yesterday, which was a little bit sad, but I think they had a great run. Also one of the better series that we watched. I mean, that Game 3 versus Liquid felt so nail-biting. Yeah. It could have gone either way at any point. And we see the love that, of course, for example, between Blitz and Stormstormer. We saw it in the video in the start as well, the hugs. A lot of love and respect for each other. And of course, for Entity, this was their first ever TI. We say goodbye to 5 first-timers. With that, we still have 15 left in the running, though. And that's quite good. We'll keep track of that for sure. But one thing that we also wanted to keep track of was two-time hopefuls, because there's not that many players left in the competition that have previously already won a TI. We actually only have 4 players, 3 coaches. Here's the 4 players, Effie. I am so excited to see Y and Faith be on here. Obviously, these two have played together on Wings. They won a TI together, had a bit of a sad story afterwards with how the organization fell apart, but here they are. They were so close last year, and they are, again, so close this year. They are playing in the lower bracket, but they're still feared by a lot of teams. Matu, it's his last year playing before his retirement, so the entirety of Team Liquid is feeling that way, just feeling that pressure. And he's playing like it's not his last TI. Absolutely. The way, like, he just not give a damn. Like, he's ready to go. And on the other side, there is also Puppy, the only player that has ever attended a single TI, and seems like he's ready to take it. He's ready to take it again, live that ages. And he's doing it as a player all the time, because normally when you're old-timer, you turn into a coach. So you have the 3 coaches that have won a TI and are now coaching. That's right. We got Zhao8, we got Aoi, and we got Heen. So one interesting point about these guys is that Heen actually won as a coach, whereas Zhao8 and Aoi won as players. So I wanted to ask you guys what you think is the difference. Does that make a difference? Is the experience as a player more important, or because as a coach you would have made these motivational speeches that you need to do before? As a player, maybe you can't do that, but you know the pressure yourself. I would say it's a little bit of both, where the experience of being a player offers you something very specific that maybe someone who's a specialized coach doesn't have, but also someone who is a specialized coach who has been working with a team for a long time and is capable of talking to and motivating people in a certain way is also a skill set that being a player doesn't necessarily provide for you. Yeah, for sure. Absolutely. Absolutely. And there must be also such a world of knowledge in all those guys' brains about what it is like playing at a TI. And we'd love to pick their brains at some point, but we can't. But what we do have is a Dota 2 historian that is going to teach us a different lesson. Ah, I see you're still thirsty for more from the Dota archives. I'd be happy to oblige you. One thing we've yet to discuss is, of course, what makes Dota truly shine. The teams. Disparate individuals, coalescing, united in a bond of kinship, of determination. A singular goal, to lift the Aegis and be canonized in the lore of Dota. Brave souls, committed, daring, intelligent, industrious. Legendary. I think about Dota, I think about the first Navi. Come on, that's what kind of got everyone. Everyone was a Dendi fanboy growing up. They win basically TI1 to TI3 in the finals. That was like the hypest squad to play the game ever, in my opinion. It's minute 3, we're all top, you know? It was like a bad Counter-Strike idea or something like that, like rush B, you know? We're just rushing B every game and we're somehow winning. Team Secret, they've got an all-star lineup. They have been the ultimate favorite for very many months. I think the original Secret roster was like super iconic. S4, Puppy, Kuro, that team was like super awesome. Going to this TI main stage and picking first pick Shadow Fiend into second pick Anti-Mage. Sunglasses on, like I don't know what you're smoking. If Artur wants to do some stupid stuff, you go with it, you know? And you make a good meme though. You make a good meme once you get out and lose after that one. Because the reverse video is too good, you know? Sunglasses, that's the reference. It's fine, you know, you can pretend like you're the shit, but don't vocalize you're the shit. Not quite how one would have put it, but indeed as the fable of Icarus tells us. Fly too close to the sun,
And all those sunglasses will be good for is blocking the glare as you tumble back to Earth. Your wings melted. But not all wings wilt in the heat. 我最喜欢观看的队伍是 TI6的 Wins， 因为就他们的战术打法都比较有意思，比较新颖吧，然后战术也比较多变。The first team I was a big fan of when I was watching was Wings Gaming. They picked so many weird heroes and didn't understand anything. I was like, these guys deserve the win. Everyone else is just doing the same thing, while these guys are doing something special. Honestly, like watching Lynx, it looks like they had foresight cheats or something. Like they just knew when teams are going for the towers, and Faithgun would already be TP'd there, and Shadow would be like hiding under the tower. It was something insane. I think how quickly Wings went from an unknown team to the best in the world was really crazy. Like people, there were like whispers about, hey, this team's pretty good and stuff, you know? And we got voted into that summit as like the joke team, like we were atrocious. And you know, we scrim Wings and they beat us in like 15 seconds. They proceed to win that summit and then they proceed to win TI. And we're like, wow, those guys went from like, who's Wings to, oh, well, wow, they're the best. Okay, that's who they are. You couldn't help but not root for them. Like they were like the supreme definition of like a dark horse. 我觉得国外队伍让我选，就是最能代表的可能就 OG 吧。因为他 TI8的时候就是在一个不被看好的情况下就夺冠了，很励志。然后过了1年以后，大家都忽视他以后，他又以一个完美的姿态去碾压了所有对手，继续夺冠。所以 Other teams came to these events and they weren't even close to OG. I think the first one, TI8, I think LGD got really close, could have won. So I can't really say, but TI9, like absolute domination. I don't think any team had a chance to beating them. It was just so ridiculously one-sided. Ah, yes, OG. I wondered when we'd be hearing that name. The underdog story is a popular trope amongst players and supporters alike. It's hard not to root for those of whom failure is expected. But perhaps in some cases that expectation is misplaced. Some of these chaps really are jolly good at Dota after all. For me, it's Puppy, just because, you know, he's the only player who's been to every TI winner. He's just been so good for so long. I mean, Puppy was just the first like really good captain in Dota. And he also played Dota, first Dota, and he was always on top. I mean, of course I'm contending for that one probably, but it's but I'm sharing it with Kuro, I would say, and Seb. Ну, я думаю, Себ, потому что это игрок, которому там уже 560 лет, который играет с начала доты, поиграл там на всех позициях, не знаю, поразговаривал со всеми на всех разных языках. Seb has been here forever and staying here, also winning majors and stuff coming out of retirement. Like he wants to win everything he plays, so he takes like personal offense when he doesn't win. Nodwin is the most iconic players of all time for me. Mainly it's about his one, and then also the way that he leads the team. I learn a lot from him as well. 如果让我选那个一提到 Dota 就感觉国内国外都很有代表的。从团队方面来考虑，就是如果从职业选手的角度来考虑，肯定是 Nodwin。但是如果从就是个人魅力或者个人喜好的话，肯定是苏梅尔。如果要我去第一时间想在 Dota 最能代表 Dota 的选手，可能会讲苏梅尔吧，因为他当时就在我还不是很厉害的时候，给我印象特别深刻。Look at Sumail. He made TI when he's 15. I think he's like the poster child for like rags to riches, like pro player from nothing, just because he's just insanely good. And at TI5, there was probably the single biggest gap between a player and every other player at that tournament. He was just like completely untouchable. Everyone else could have just snapped their keyboards in half when they got on stage because they see this little 15-year-old kid on the stage. You know, you just can't do anything. He's just too good. Dota allows all to flourish. Young, old, veteran players and the unknown. With each international, with each opportunity to clasp the ages comes a chance for glory, for a new order, a new master. Which player will drag his comrades to the summit of success and look down upon the bodies of their foes broken and bruised at the foot of the mountain of victory? Well, this is the archives, not some kind of juice joint or snap house. Go on, get out. Go watch Dota if you want to find out. Go! Go! Good night.
Oh, that was a fantastic lesson with our Dota 2 historian, Pyrian Flax. A trip down memory lane. It's always interesting to hear the players' thoughts of who they think are the iconic but the names that we hear quite most are like Puppy, Seb, Kuro, No-Tail, Zhao 8. Like, I think these are the greatest 5 players that ever touched the game. Some of them, like as talked in the video, they go way back to Dota 1 days, and they were also great at playing Dota 1. So, you know, they've been playing this basically for 15, 16, 18 years, some of them. Yeah. And the fact that they're still active and still having an impact in how they play, how they affect Dota and the scene right now is just beyond impressive. But I'm really glad that they brought up Sumail, actually, because the legacy that he left, just kind of taking the scene by storm, coming into TI as a 15-year-old and winning it all, I think that achievement in and of itself is kind of a step ahead of a lot of the others for me, simply because he wasn't even a legal adult yet. You know, he doesn't pay taxes. Everybody says this is the new Sumail. Like every year, there's always a new Sumail. But they're never as young. It never really happens. Very rarely happens. Yeah, he would not be able to play Pango at the time, if Pango was available. No driving license, with 15 years old, cannot play it. But yeah, he had other heroes that he played, like just, I don't know. The way he played game back then was like completely different. And as they said, like no one was like Sumail, 3 empty spaces, then everybody else. The way he played Dota, definitely completely different. And we're going to also look at something completely different. It is Slax and Casey. We are completely different. We're completely different in the best way possible. Guys, we've had a talk today. I know it's barely after 10 a.m., but I need you to act like you've had all the caffeine in the planet. Who's excited to see some Dota today? Oh, damn! They are not playing. Well. Looks like we have a real barn burner here. We've got both teams well represented by the fans, but I have been told the #1 fan of Beast Coast. Are you guys going to be nice? I know you're LGD, but can we have a handshake? That's what I'm talking about. Now, when you came up to me, you said, I am the #1 fan, the #1 groupie of Beast Coast. That is correct, yes. Now, why is that? Well, if you check my Twitter bio, it says I'm the official Beast Coast groupie. Oh, I didn't realize that Twitter was always correct. Well, I mean, I'm married to my lovely wife, Paige, the brand director of Beast Coast. Hi, Paige, get up here. Get up here. All right, tell me about your outfit. We are representing the mascot in style. Well, this is Crest, our lovely little guy. He's our mascot. He's cute. Everyone loves Crest. What about? Crest is the Beast Coast mascot. They're a little amphibian. They're kind of like a Pokemon. Am I allowed to say Pokemon? Yes, we're all friends. Don't worry. They're kind of like a Pokemon, and they live in the ocean and near South America, and they're really cute, and everybody loves them. And are we going to be wearing this the entire day? Probably, if it's if the weather holds up. It's very warm in this suit. You don't have to promise us anything. Okay, I want to hear one more time. Who's here for Beast Coast? Who's here for PSG.LGD? Who's here for Slacks? Okay. Before we go back to the panel, I did want to tell one little story. Every single day, this lady has been first in line all 4 days. She wakes up at 5 a.m., and it is an incredible thing. First in line, last to leave. I just want to know, what brings you in here so early every single day? I just want to watch good Dota in a good seat. Oh, what? Is the Dota good? Yeah. It's good. All right, that Dota is good! Give it up for the most dedicated fan in the arena, and we'll throw it back to you guys. Thank you very much, Slax and Casey. Indeed, I like how Casey kind of ambushed the audience. Do you like Slax? They're like, yeah, we do. Yeah. A little bit. Very good. Shout out to that girl, though. I respect it so much, just wanting the best seat in the house, so coming in before everybody else. That's true dedication. And value, because there's definitely some great games coming our way today. So you want to have the best seat in the house for these. We've got 4 series coming your way. It's all in the lower bracket. 4 elimination series. This is brutal
but good, because this brings out the best Dota in all of these teams. We're gonna have, of course, later on, we have Thunder, Awaken, and Aster. They got dropped down yesterday. They're gonna play up against the winners of our first 2 series with OG and Liquid, a rematch from the group stages. And Beast Coast, PSG.LGD will be our first match. Jenkins, which one are you most excited for? I mean, these are all really brutal. You know, Beast Coast, LGD, you have either the favorite, one of the favorites being eliminated, favorite from China being eliminated prior to the event, or South America potentially losing one of their teams as well. Yeah, it's getting to the point where like entire regions are potentially going to be dropping out, which never feels good. But of course, at some point, it's got to happen. And the saddest thing is when regions knock each other out, with Beast Coast and Hokori, for example. Oh, they knock themselves out, yeah. If LGD wins today versus Beast Coast, then they're going to be going up against Aster next, which means that there's only, at that point, there will only be one Chinese team left. And obviously, both of these teams have a lot of fans and are carrying their own torch, so to speak. So it's going to be a little bit sad regardless of the outcome. But I'm really excited for this first game more than anything. I think that LGD have had an excellent story. They've never dropped down to the lower bracket before, so I wonder where it's going to take them. Maybe this is what they need. Yeah, and I mean, Beast Coast in the lower bracket, they play different Dota. They're just so volatile, and they did manage to beat EG, which was a little bit of a surprise there, you know, considering how well EG played in the group stages. But Beast Coast, you know, when they get there, they just some different beasts. Like the way they play, that you know that, and if this team gets momentum, I think this first series is going to be really interesting. They've beaten LGD before. ESL 1 fall, they 2-0'd them. However, in group stages, in the last year, it is they're 0-2 in Animajor and 0-2 at TI10 to LGD. So it depends on what version of Beast Coast we're going to see and what version of LGD. Yeah, who knows? LGD in the lower bracket, as Effie said, we don't know what that looks like yet. We obviously, well, we do, because they did 2-0 boom. Looks scary. It looks really scary. But just speaking of which form they're going to be in today. Oh, hold your horses, Effie. It is time. It is time for our first match of the day. The horn has sounded, and that means we need teams. Bring on PSG.LGD. Versatile team in Dota 2 at this international. We have no idea what they're going to bring to the table other than some top-tier S-class Dota 2. The same, though, for their opponent is Beast Coast in the lower bracket, a different beast indeed. Beast Coast coming on the stage. They are already guaranteed top 8 with this exact same roster, though. They did manage to get top 8 before they want to go further this time around. We got ourselves C-Smile. Give us an extra round of applause for C-Smile, please. Unfortunately, the rest of his team has to play from the hotel rooms in isolation. So extra love there on the stage and extra respect. This team, regardless of whether they are in isolation or not, they are going to give it their best. And this should still be a tough series for either team. Who's going to be the one that you're looking more forward to most, Lacoste? This man right here. Definitely, this is the guy that, you know, he is setting the meta trends with his heroes. This is something that he does so extraordinarily well that every region is like, oh, Jinki, you know, we need to see what he's doing to be able to copy that. Not necessarily copy to full extent, but also like take some ideas from them and then try to implement that into your own team. Yeah, actually, I remember when he was one of the first people to play the 4 Null Talisman Coddle from the support role. He was one of the innovators. He's constantly playing it in his pubs and
asking for it. And this was before Coddle was the beast that he was in the meta at that time. So thank you for that. Thank you. Nobody knew you could one-shot creep waves with Coddle until you go this ridiculous build. You're like, dude, you're a support. What are you getting null talismans for? It's like, oh, you can one-shot waves now. And these Coddles were getting so farmed. I remember the LGD, they also did the IO Helm Dom, where the Lycan shared the unit, and Jinkyu was running around with the shared micro control unit. It was insane. Like, this team is so innovative. We also can't forget their carry axe that they popularized and perfected around the time of the Animajor last year. That was one of their best performances, and also they were the trendsetters in that regard. It just became in every game, in every pub afterwards. But yeah, just going back to Viscos a little bit, unfortunately, they are sick and they can't be playing together, but that also means, Sheaves, that they're playing without their coach. It does indeed, Jane, because that's going to be, it's going to obviously hinder them, but at the same time, this squad has been together for so long. How much do you think it will? That's what I was going to say, is that I don't think, I think this is the team that would probably care the least about these restrictions. Potentially. I remember watching an interview with Stinger, and he basically mentioned that they were uncomfortable during the group stages, but got better around day 3. Well, let's bring us on the draft for this first game of the series. PSG.LGD versus Beast Coast. Game 1. Game 1, and so much on the line for these teams. PSG.LGD, we said it at the first day of the entire event. If PSG.LGD doesn't come first, it's a disappointment for them. And for Beast Coast, they stuck together with this roster after TI9 because it worked, because they got top 8. They would love to go further this time around. Of course, last year was a bit of a disappointment for them, but they stuck together, and here they are again, going further for both of these teams. I mean, top 8 is nice. You look at the achievements, it's like, wow, you came top 8 at TI, that's great. No, they You're want to not go satisfied. further. You're No not one's satisfied with top 8, definitely, because if you're carrying the momentum, like with each win that you get, like you want to go further. And I just want to mention, like, K1 as a carry player, he's the guy that did set a lot of trends as well. People were studying his farming patterns. Yeah, they were. You know, you are familiar with Arteezy farming patterns, but K1 at that time, like he was stepping away from his own team. Team needed to play 4 versus 5 pretty much until he said, okay, I'm ready, guys. He demands salves, he demands clarities, and the funny thing is he does this in pubs too. It's just how K1 is. He just thinks his brain cannot work in a non-efficient way. I do want to say one thing about Chris Select being the only one on stage. He's probably the one guy that would find this really funny. Like he's such a troll. He is such a troll. You can see him in all of his interviews trolling Avo because he knows that Avo won't want to directly translate what he's saying because it just sounds stupid or it's goofy or something. So yeah. And I also want to mention that when RNG played on stage, it was only ex-Noah. He won the hearts from the community, and C-Smile probably going to do the same thing, you know, being the lone warrior there. Absolutely. But speaking of RNG, it was Somnus, after he announced his retirement, found Ame in a pub right afterwards and basically cheered for him. Ame said in an interview that it made him emotional, but he is just carrying that torch for him right now. Ame's too buffed at the moment. Yeah. But to just look at the draft a little bit, I think it's actually really interesting what Beast Coast did here, because yesterday LGD played their Undying first pick, and they paired it up with a Visage on 8th. So I was wondering what Beast Coast's approach to that would be, if they would play against the Visage, but they decided to just take it for themselves, even though when you think of Beast Coast, Visage doesn't really come to mind. So I think that's really cool. I wonder if they've practiced it before, if they're just super confident in it anyway. I mean, this is a team that can play every hero. And Go ahead, Lucas. Okay, I'll go. It's no surprise that they picked up Snapfire in the first stage, because this is the most versatile hero for Beast Coast. They do play it at 4 out of 5 different roles, which is pretty impressive. And also, I mean, having that flexibility does so much for your team. And against one of the reasons why Snapfire is so popular, not because Undying's also there because of the Tombstone. Snapfire is the only hero pretty much besides Ursa. It's a better version of Ursa that can kill the Raid Pact, and it's Raid Pact meta.
Exactly. So that is definitely the reason why Snapfire got catapulted into success right now. And this happens often with heroes when they're picked to counter specific heroes, but then teams remember just how good they are and how easy they are to first phase. This happened with Lion during the Animajor last year when people kind of forgot about him until Puck was the #1 hero in the meta at the time. So he was just picked to counter him, and teams remembered that they could pair this hero with a lot of things and first phase it. So that basically happened to Snapfire, who had been a little bit forgotten. But obviously the Little Shredder, excellent in killing Tombstone, and she's just a strong side laner, so you can play that early aggression versus LGD and just try to make their lanes harder. The nice thing about Snap as well, aside from the ability to like kill these like ward type units, is the fact that you just never lack damage. Like you can go for basically any other heroes. You can go like late game, team fight, whatever. You know, low cooldown stuns. And it's like if you want to kill somebody, no matter how far behind you are, if you stun them and then follow up with the Mortimer's Kisses, they're going to die 100%. And I think that's a reason why a lot of people really like Leshrac as a hero. Batrider maybe a little bit weaker, but feels the same. Shadow Fiend, like these heroes, no matter how far behind you are, you always have the comeback potential of pressing a stun and then the big ult. This is one of the, I'm going to call it a support, we don't know where it's going to go, but one of the heroes that does scale so extremely well into the mid game, into the late game. Like some of the heroes do tend to fall off. Like for example, I don't know, Undying here, you know, if he's not having a good time in the lane, the hero is just not going to give 100% of what he's supposed to do. But Snapfire, you always have team fight, you always have save for your own team. You do have, like as you mentioned, these ward type units that you can kill. Just overall well-rounded hero. Yeah, and just we mentioned the Leshrac briefly a little bit earlier in conversation, but I think this is a very high value hero for both of these teams. I think Beast Coast mostly are going to be looking to pick it up for themselves. It's one of their staple heroes, particularly on Whisper. But if you pair it up with something like a Visage, who gives you the early tower push and aggression, and of course the Snapfire with her minus armor, not only does it give you objectives, but it gives you that death wall that everybody is so raving about this match. Lesh has an 81% win rate in main stage, and I think the games that we've all watched, it looks amazing. Even the games that it loses, it is a very difficult problem for the enemy team to address. It seems like Bloodstone's just a little too powerful. But only in his hands. Only in Leshrac's hands. It's not tied to any other hero. Like none of the heroes do build Bloodstone. It's like the Meteor Hammer of this patch. It's just OD Meteor Hammer, and now it's only Bloodstone Leshrac. Oh, you don't like the Naga Meteor Hammer? I guess that was like one in occasionally people would do the Naga. I don't think it was great, but it was definitely fun because you felt really good if you pulled it off because it took a little bit more skill than the other you're Meteor stunned for Hammer. 1.5 seconds now. Do you remember the Nyx Meteor Hammer? That was cool. That one, a couple of heroes with the Meteor Hammer, I right? enjoyed that one. And yeah, Pangolier, so far he's not afraid of any of these heroes. PSG.LGD did a good job protecting him in the second banning phase, removing the Bloodseeker, Batrider, all these abilities that go through Magic Immunity, even Naga Siren with the Aghanim Scepter, which is not that popular, but could still work. You know, we see different builds on Naga these days where they tend to play map a little bit more aggressive, play with the second item with the team. You know, with this Enchantress coming out, not only does it add to the early aggression style that Beast Coast seem to be building for themselves, it also opens up the potential to Mirana, who's become a lot more popular this TI. We've seen her played in the 5 role and the 4 role, and a lot of teams, even Secret, have played it in the offlane role on Resolution. So this could be something that LGD are looking at simply just to counter the creep in the early game. It wouldn't be bad. You can pair it with something like a Sand King or any kind of stun setup on the offlane. But if you do that on the side of LGD, if that's the approach that you choose to take, you have to pick some versatile team fighting type of carry. Yeah, and also Enchantress does provide the spell mechanic against Pangolier, something that is very annoying if he gets the shield crash off, and yeah, there goes the Mirana. 2 range heroes, like Beast Coast, they don't have really heroes that jump the backline. No, they're gonna need to have something that like these heroes are afraid of. Puck is still available against Mirana, against the Pangolier role. They do have like 1 silence, no reliable stuns. This could be a good Puck pickup. I don't like that for Beast Coast though. I feel like they've already got these 3 backline heroes, and Puck is something that's a little bit dangerous, right? I think you kind of have to go the double melee route here. So they go for the Void pickup, which combos really nicely with the Snap. Mortimer's Kisses into the Chrono. You're going to kill almost anybody, but it's also a hero that can just like sit on the Drow. You can do it without Chronosphere,
You just BKB, jump on the Drow, and she loses all of her damage, and none of the other heroes do anything to you. Or you chrono her if she's too much of a problem, you kill her from full HP. I've seen this matchup go both ways. It goes both ways. Because if Faceless Void doesn't get his timing on a BKB, it can get rather difficult. The silence does ruin the hero, and they do have a decent amount of burst damage on side of PSG.LGD. But looking at some of the save mechanics that they have on Beast Coast, you do have like healing from the Enchantress. You do have Cookie that could push you out of the trouble. Even Visage Bird to split up the combo potentially from PSG.LGD. But not only that, just on the topic of Faceless Void, he offers utility in that he can stop the Pangoliers Rolling Thunder if it's too much of a nuisance, right? It's not the ideal way to use the Chronosphere, but it is a BKB piercing disable. It also gives him a way to kill the team's Tombstone if it's in a bad location, right? You chrono, kill the Tombstone, get out if your snap is compromised. I think LGD might be going for something like a Centaur here, actually. Because if you look at this Drow Ranger, the only thing scaring her right now is the Faceless Void. But if they have another means of disengaging, she already has these two heroes to body for her in the Undying and the Pangolier, right? I think a third one would be just the right amount that you need, because Beast would be kind of sick. It's like, Beast is cool too. It's like similar, except it beats the Void. Well, then again, there's the Enchantress, so you can't go the Boar build again. That's why Void Enchantress is so nice, because you can't go the Boar build to beat the Void, and then the Axis build, I think Void does very well against. And PSG.LGD did ban out the puck because they have limited amount of silences. There is, Drow Ranger silence, but it's very difficult to execute. Like your Mirana doesn't really have a setup to kill the puck, so they need, like something elusive could still work out really nice for Beast Coast. There's also Tiny still in the pool, which, oh no, I can never see the first phase. The first phase bans are always... But that archetype of hero who can play on low cooldown and who can jump the backline as well, alongside the Faceless Void, would be a really nice thing for Beast Coast to have, because I don't think they want to be in a situation where they're depending entirely on their Void to be able to take these fights. I mean, obviously the Visage does something really cool that other heroes don't, in that he forces enemy teams to play into him, because if they don't, he's just going to take all of their towers. But you need a hero that can capitalize on that right now for Beast Coast. Mars is banned. We're looking at probably like a melee hero. I agree with you, Effie, in the fact that like they kind of need somebody to go in front line for the Drow Mirana, a stunner, so like Sand King Slardar maybe. Maybe go for the Slardar. So minus armor on top of the Drow, reducing armor to 0. Quite a lot of damage between those two heroes. If Beast Coast needs more tank in the front line, there's still Kunkka available just to be able to have like reliable catch, because they're also like they lack a little bit of a playmaking coming out from the mid lane. And a frontliner. Like they kind of need a guy to run in. Yeah, I mean, this is Beast Coast. What if they just do some, what if they just flex the snap to mid? I don't necessarily think it would be bad either. So if they flex snap to mid, then it means they're looking for a 4 position. That's just a potential. They don't necessarily have to do it, right? But that is what Beast Coast were famous for way back in the day. It's what kind of got Chris Lex some of his notoriety, is that snap mid that he just unleashed upon other regions, and they started to do it too. It will be the Storm Mid. So backline, another backline jumper for the Drow. They're going, and also a hero that can jump and kill the Pango before he gets his roll off. So they're kind of doubling down on this backline jumping. And also having Snapfire plus Storm Spirit, you even like Faceless Void, you always have kill opportunity in this game, and there's no real like counter to it other than Undying Heal, which is not gonna be enough. I think that the Storm Spirit is good simply because there is a lack of real disables on the side of LGD, but I do feel that LGD have really good heroes to take this Roshan early and just play tempo. Like this Slardar minus armor is going to shred this Visage, and if Drought gets a couple of items, Mirana does her job, rotates a little bit early, and they're playing around this Tombstone, then I feel that Storm maybe will not be in a position where he can play into that, because it is a hero that needs a little bit of time to pick up some items. Yep, sounds like a well-rounded lineup for both teams. We're just going to have to find out which of these two teams will get a head start in this best-of-3 series. We'll play a little bit better in this first game, and we're heading over to our commentary team to do it. It is Trent, Lyrical, and Gunnar. Thank you so much, Shiver, and my goodness, Dota fans the world over, we got a great one for you today. Beast Coast facing off against LGD. I'm so excited. I can't wait for this game. These two teams are awesome. How you guys feeling about the draft, though? I think it's interesting how it played out.
वेल हमारे इंग्लिश डेस्क के जो कास्टर थे कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उनको हटा के अब हम खुद आ गए हैं बिकॉज गेम स्टार्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, डे नंबर 4 Dota 2 दी इंटरनेशनल 2022 का मेन इवेंट चल रहा है. आज क्रैट काफ़ी लोगों के सपने टूटेंगे. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट एन एंटायर रीजन माइट बी एलिमिनेटेड. यस, दिस इज द डे ऑफ लोअर ब्रैकेट. सारे लोअर ब्रैकेट के मैचेस हैं. अभी तो हमें ये भी नहीं पता है कि हमारा तीसरा और चौथा जो BO3 है उसमें कौन सी टीम क्या करने वाली है. बट पहला जो अभी BO3 है उसका ड्राफ्ट जो देखा इट वाज लुकिंग गुड. स्टॉर्म दिखा हमें बीस कोर्स की तरफ. ड्रो को हंट डाउन करना है. देन दे नीडेड सम मोबाइल. उन्होंने एम्बर पग बैन करके काफ़ी कुछ डिसेबल तो कर दिया था. देखते हैं, दिन की शुरुआत हमेशा स्लो होती है. जो असली पेस प्लेयर्स भी पकड़ते हैं, हम भी पकड़ते हैं, वो दूसरे तीसरे मैच में या दूसरे BO3 तक तो हो ही जाता है. अच्छा, लेकिन दोनों टीम्स में से आपको ज़्यादा कॉम्प किसका पसंद आ रहा है? PSG का. And is there any specific reason behind it? The only reason behind choosing PSG.LGD is their mid. Nothing to say. He's a young player and he is very very dynamic. He is very talented. और मुझे जितने भी जो नए प्लेयर्स आते हैं, यंग प्लेयर्स, ये सब सुमेल की रिजेम्बलेंस कराते हैं मुझे कि दे आर समथिंग जिनसे आपको कुछ नहीं पता आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, और ये ऐसा कुछ करके दिखा देते हैं, बस अलग हो जाता है दुनिया. अब हर बार सोचते हैं फिर से कोई 15-16 साल का एक लड़का आएगा और अपनी छाप छोड़ के जाएगा इंटरनेशनल के स्टेज पे. बट क्या वो दिन आज होगा और डू वी हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मोर इयर्स टू गेट दैट टू हैपन? ऑल्सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा आपने नोटिस किया स्टेज पे बीस्ट कोस्ट के 4 प्लेयर्स अपने होटल रूम से खेल रहे हैं, आइसोलेशन से खेल रहे हैं. सिर्फ सी स्माइल हैं जो स्टेज पे आए हैं. एंड दैट सॉर्ट ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ व्हाट हैपेंड विद सॉमस अ फ्यू डेज अगो जब RNG खेल रही थी अगेंस्ट बीस्ट कोस्ट, नॉट बीस्ट कोस्ट, सॉरी, एंटिटी के अगेंस्ट उनका गेम हुआ था. 2 घंटे का मैच चला था. वहाँ कैन फॉरगेट हू दे वर प्लेइंग अगेंस्ट. बट जैसा मैं कह रहा था, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्रैट. ऐसी सिचुएशन में आप खुद एक प्रोफेशनल प्लेयर रह चुके हैं, प्लेइंग कंपीटिंग इन बोथ डोटा एंड CS. इमेजिन एक टीम स्पोर्ट है, आप स्टेज पे अकेले हैं. हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू फेस लाइक द कॉम्पिटिशन. यू नो, जब आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हो और एक टूर्नामेंट चल रहा होता है ना, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स कि सामने वाला इंसान कैसा है. जैसे अगर आप मेरे सिचुएशन को कभी देखोगे, मैं अगर कभी सिमर, जैसे मैं CS खेलता था, तो हमारे जो मित्र हैं सिमर सिटी, वो IGL करते थे, और उनका जो तरीका है वेरी रूड. इट्स लाइक ही इज मैक्रो मैनेजर कि मैंने तुम्हें लिमिटेशन ड्रॉ करके दिए, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट. एंड लाइक काफ़ी बार प्लेयर्स खुश नहीं होते थे एंड गेम प्ले नहीं निकलता. तो आई यूज्ड टू टेक ओवर, और मैं भी बहुत ज़्यादा, लोग कहते थे कि मन्नू गर्म होके लाल हो गया है. यहाँ पे ड्रो को काफ़ी ज़्यादा डैमेज. विसाज एंड Enchantress, they are not willing to leave this draw at any case. One more shot will be enough, and yes, they got the very first blood. आज के दिन का Day 4 मेन इवेंट, लोअर ब्रैकेट मैच का जो पहला मैच है PSG.LGD वर्सेस बीस्ट कोस्ट. पहला फर्स्ट ब्लड तो आ चुका है. What a cheeky gang. Yeah. So it depends. मैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, मेरा गरम पूरा लाल हो जाता था कि भाई ये क्या कर रहे हैं प्लेयर्स, व्हाई दे आर कंफ्यूज्ड. जो चीज़ हम बेसिक्स होते हैं उसको फोकस क्यों नहीं करते. और जब ऑडियंस होती है ना, तो हाथ कांपने चालू हो ही जाते हैं, और आपका जो कॉन्फिडेंट मूव भी होता है, वहाँ पे भी आप एक जो कहते हैं नॉर्मल गलती आप करते नहीं, वो भी आप करते हो. लेकिन फिर आपके टीममेट्स कैसे भी हो, अगर वो आपके साथ खड़े हैं, यू फील लाइक यू कैन फेस एनीथिंग. सो आई थिंक सी स्माइल, ही हैज़ टू जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन द गेम. फिलहाल जिस तरह से यहाँ पे शुरुआत करी है बीस्ट कोस्ट ने, looks like things should stay in their control for a little while. एक चीकी गैंग बॉट लेन पे किया है इन्होंने. ड्राउ रेंजर का फ्री पिक मिला. अपने सेफ लेन को बीस्ट कोस्ट ने थोड़ा सा पीछे रह के खेलने के लिए बोला था, एंड दैट इज व्हाई वी स्टिल सी देम क्वाइट क्लोज टू देयर टावर. वेव आराम से पुश करने दी इस तरफ को, एंड अब अगर LGD एक बार फिर से एक्सटेंड करती है, मेरे को लगता है बहुत अर्ली गैंग्स देखने को मिलने वाले हैं हमको बीस्ट कोस्ट की तरफ से. अब मुझे बीस्ट कोस्ट की तरफ पे I don't want to jinx it, but okay then. उससे पहले यहाँ पर कुकी मारकर एक काफ़ी अच्छा इनिशिएशन किया PSG.LGD के वाई पे, जो उनकी पोजीशन 5 अनडाइंग खेल रहे हैं. एंड इट्स नॉट इजी टू लेन अगेन विसाज के पास जो मैजिक डैमेज है, एंड एवरी टाइम यू नो अटैक विसाज, आप उनका जो बार भरते हैं, उसके बाद जो वो डैमेज रिफ्लेक्ट करते हैं, इट्स टू मच टू हैंडल. ड्रो एंड अनडाइंग, मैं ये नहीं बोलूँगा था बड़ा पैसिव लेन होगा, बिकॉज अनडाइंग जब भी लेन के अंदर होते हैं, अनडाइंग कैन हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट, ग्रेट प्रेजेंस. बट अभी के लिए द स्नैपफायर एंड विसाज डूइंग मच बेटर. स्लडायर एंड मिराना दोनों काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है. एक मीली फिजिकल डैमेज, एक रेंज फिजिकल डैमेज, और अगर वॉइड को स्पेस नहीं मिली तो बहुत बड़ा रीज़न ये दोनों हो सकते हैं. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि यू नो लव टू सी दैट वॉइड है,
स्टॉर्म है, दोनों काफ़ी फ्लैशी और अच्छे प्लेयर्स लगते हैं देखने में, बड़ा क्रेजी गेम प्ले इनका होता है। बट द प्रॉब्लम इज़ अगर भगवान ना करे यहाँ पर वॉइड का गेम स्टार्टिंग में लो हो गया, देन वॉइड विल रिक्वायर एटलीस्ट 15 to 20 minutes टू गेट दैट स्टेबलाइजेशन, दैट फार्म, बिकॉज टावर तोड़ने के लिए ना यहाँ पर स्टॉर्म इनेबल रहते हैं ना कोई विसाज। आपको टावर तोड़ने के लिए यू नीड सम फिजिकल डैमेज। विसाज भी अगर करेंगे देन विसाज विल बी गेटिंग हैंड डाउन। और वहीं पर इफ यू टॉक अबाउट मिराना, स्लाडार, इट्स लाइक ड्रो द अदर प्राइम प्लेयर्स जो टावर के अंदर एक चिप डैमेज कांस्टेंट थ्रेट ऑलवेज रख सकते हैं। बट फिलहाल अर्ली स्टेज में तो आप टावर के बारे में सोचने से ज़्यादा अपने ऑपोजिशन के बारे में सोचेंगे। लेनिंग फेज अभी हमारा चल रहा है मिड पे स्कर्मिश होते हुए, एंड दिस इज गोइंग टू बी द डेथ ऑफ नथिंग टू से। और मैंने जिक्स कर दी, सॉरी सी स्माइल, आई स्पोक टू सून। पहले नहीं होता था, पहले स्टॉर्म स्पिरिट के अंदर आप हमेशा रेमिनेंट एंड ओवरलोड चार्ज मैक्स आउट करते थे। ओके देन यहाँ पे एक सरप्राइज विजिट आई है रिंक्यू की। ओके देन इज ही गोइंग टू नेल दिस लास्ट हिट? ओहो! स्माइल का जो फेरी फायर गेम प्ले था इट वाज इनक्रेडिबल। यहाँ पर फायदा ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे स्माइल को होगा बिकॉज उन्होंने पहले मारा, एक्सपी उनको ज़्यादा मिला होगा। बट मिड मारा है वर्सेस पोजीशन 4, तो ओवरऑल फ़ायदा यहाँ पे PSG.LGD का है। तो लुकिंग ग्रेट, 20 कोर्स से शुरुआत अच्छी करी है एंड एटलीस्ट दे आर नॉट शाई, दे आर नॉट स्कैर्ड of playing against the Titan. PSG.LGD lower bracket में I don't know what's the unfortunate in this, but वो deserve नहीं करते। वो आज तक दो काफ़ी टाइम से उनकी जो जर्नी होती है, they always manage to secure top podium position just because वो हमेशा upper bracket में खेलते आए हैं। 2018 को 1900 सब जगह PSG.LGD ने गजब ढा रखा होता है। Because like what I remember 2018 में they secured the runner-up position, 2019 में top 8 they secured third. They lost to Liquid in the lower bracket grand finals, and 2021 के अंदर जब टीम स्पिरिट जीती थी वहाँ पे भी they were runner up, जहाँ पे आमे का टाइनी हारा था एंड सबका दिल टूट गया था। And it was Ember, Toronto Tokyo Ember. It was a beautiful game, but वो तो collapse का दिन था। But आज का दिन किसका होने वाला है? I like challenging my memory. Because sometimes I feel like कि you know my muscularity will get affected if I don't remember exactly why. I mean it does happen. अगर आप अपने ब्रेन को भी एक्सरसाइज नहीं देंगे तो you end up getting stagnant. And I think Dota is good in that way. दिमाग की तो कसरत हो ही जाती है अच्छी खासी आइटम बिल्ड याद करते करते। Oh, nice deny. Gojira, my boy. Gojira ने एक बार हमें नेक्सस एक्शन खेल के दिखाया था and it was a great game play. तो नाम और हर बार ये मारने के बाद ये क्या स्पैम करते थे? Notice me please. Denied. मरने के बाद? Okay, you noticed nicely. Thank you for noticing. But Krat, एक चीज़ बोली गई थी कि after the previous TI that happened PSG.LGD, ये मैं नहीं बोल रहा, इंग्लिश डेस्क पे बातचीत चल रही थी। PSG.LGD हमेशा जब भी आती है एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि इस बार तो पक्का जीतेंगे, पर जीत नहीं पा रहे। Something is not getting connected nicely because PSG.LGD से बहुत सारी उम्मीदें लोगों की। नो डाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेंट्स इन जर्मन का गेमिंग एडिशन है भाई चाइना, एंड चाइना की सबसे बड़ी टीम है अभी के टाइम में, तो इनसे क्यों नहीं करेगा? बिकॉज दे आर ऑलवेज, वी ऑलवेज से दिस, देयर आर टू टाइप ऑफ ईयर, चाइनीज ईयर और यूरोपियन ईयर। मतलब यूरोपियन में ओवरसीज और चाइनीज ईयर। तो चाइना के रीजन को एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है, और चाइना की टॉप टीम होना आपको एक प्रेशर भी देता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। और पिछले कुछ सालों से दे लिटरली केम एवरी टाइम सो क्लोज। वो आखिरी तक कहते हैं ना, हाथ लगा मुंह नहीं लग पाया, निकल नहीं पाए, खा नहीं पाए। बट स्टॉर्म का एक अच्छा गया, मजाक करके आए, वॉर्टेक्स कनेक्ट करा, एंड आई बिलीव फ्यू मोर शॉट्स विल बी एनफ टू टेक डाउन दिस ऑनेस्ट QT Ame. Don't mess with Ame, trust me, Beast Coast. He is a monster, and the moment you give him a little space, he will be surprising you with some great last hit and farm. और वो फिर उनको मैन हटा, इनको हैंडल करना इज नॉट गोइंग टू बी इजी जॉब। जी, आई मीन आसान तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, बस देखना वही होगा कि ये ड्राव कब तक ऑनलाइन आती है। अभी फिलहाल अगर गोल्ड जनरेशन की बात करें तो यहाँ काफ़ी अच्छी गोल्ड जनरेशन करते हुए तो नज़र आ रहे हैं हमें उस ड्राव रेंजर के ऊपर। बड़ा वो जो फेसलेस वॉइड है फ्रॉम द साइड ऑफ बीस्ट कोस्ट, वो पहुँच चुके तीसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमें नज़र आते हैं स्टॉर्म स्पिरिट, और क्योंकि स्टॉर्म स्पिरिट की थोड़ी देर पहले मौत हो गई थी तो उनके जो लेन के काउंटर पार्ट हैं पैंगोलियर फ्रॉम द साइड ऑफ PSG.LGD, वो हल्का सा आगे चल रहे हैं फार्मिंग के मामले में।
बट क्रैट ऑन द अदर साइड एक चीज़ है जो मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा. सो चाइनीज़ डोटा बहुत नोटोरियस है गेम्स को घसीटने के लिए, बहुत लंबा. तो कितना इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है. दे ऑलमोस्ट आर अनबीटेबल इन दैट लेट गेम स्टेज, राइट? कितना इंपॉर्टेंट होगा बीस्ट कोस्ट के लिए कि वो कोशिश करे अपनी पूरी इस गेम को जल्दी से जल्दी खत्म करने. नो, ऐसा नहीं है कि लेट गेम हमेशा चाइनीज़ को फेवर करता है. ये वाज अ टाइम जब ये चीज़ बोली जाती थी. ये 2012-13 में वैलिड था, बट ये फिक्सर्स ने कल परसों बोला है, तो आप उनकी बातों को बिल्कुल दिमाग से और दिल से दूर ही रखा My source was that. You casted that game entity versus RNG and you saw who won. It was entity. बेसिकली लेट गेम के अंदर डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है. यू हैव टू मेक अ नाइस प्रो एंड कॉन लिस्ट कि भाई इस हर एक डिसीजन के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, और लेट गेम के अंदर वही मैटर करता है. और लेट गेम तब हिट होता है जब यू हैव अ लाइनअप जहाँ पर आपके पास स्पेक्टर है, आपके पास नागा सायरन है, जिसे गेम खींचने से आपको फ़ायदा होगा ही होगा. यहाँ पर अभी जो लाइनअप है, अगर लेट गेम जाएगी देन इट विल बी फेवरिंग बीस्ट कोस्ट, बिकॉज Tank in the top lane. अगेन अब स्टॉर्म होने का ये फायदा अच्छा है. देखिए 2 मिनट के अंदर 4 प्लेयर ऊपर आ गए. आपने सीधा अल्टी मारी, आपने जिप जैप किया, उसके बाद आपने वोटेक्स कनेक्ट करा, एक रेमनेंट एंड इट्स एनफ. पीछे से आपको एक कवर फायर भी आया, टीम ने सपोर्ट किया. एंड PSG ऑल्दो नेटवर्थ के अंदर अभी भी एडवांटेज उनके फेवर में है, बट जो किल का पोटेंशियल उठाना चालू किया है, जो किल्स उठाई, जो मूवमेंट दिखाई है, नो डाउट बीस्ट कोस्ट इज प्लेइंग रियली गुड. प्रोएक्टिव प्ले मेकिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे बीस्ट कोस्ट की तरफ से हमको नज़र आ रही है. लेकिन इस प्रोएक्टिव प्ले मेकिंग से क्या हासिल कर पाएंगे अगर PSG.LGD के जो कैरीज हैं वो इतना बेहतरीन तरीके से फार्म करते गए. ड्रो को देखे आमे इवन आफ्टर डाइंग अ कपल ऑफ टाइम्स, बिल्कुल लेवल 1 पे जब लेन में आ रहे थे तभी मर गए थे. He is still second right behind that Storm Spirit, लेकिन एक massive fight breaking out. क्रोनो का इस्तेमाल किया जाता है, but यहाँ पे क्रोनो लगा के भागने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं. क्रैट समथिंग इज नॉट रॉन्ग, नथिंग टू से ने अपना स्वॉशबकल मिस किया. जो हमारे प्लेयर हैं यहाँ पर विसाज, वो आराम से पिक ऑफ हो जाते हैं. यहाँ पे देखिए माना नहीं है यहाँ पर वॉइड के पास टाइम वॉक करने की, बट उतनी देर में उनके पास एक कवर फायर भी आ चुका है. बट विसाज नीड टू बी लिटिल केयरफुल. ओके, ये इन्होंने एरो मारा, लाइक ही हैड नो आइडिया कि वहाँ पे एक प्लेयर छुपा था. गोजिरा को एक बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक एरो पड़ा. अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस ट्रैवल करता एरो तो कुछ फर्क पड़ सकता था, बट ये आया स्टॉर्म ने सीधा इंस्टेंट आकर यहाँ पर स्वॉशबकल मारते उससे पहले यहाँ पर अनडाइंग को बिल्कुल इलेक्ट्रिक वोटेक्स मार के काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया. बट स्टॉर्म की आपको खासियत पता है कि जब तक माना है, स्टॉर्म को माना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. बट जैसे ही माना खत्म, स्टॉर्म खत्म. और कल भी हमने देखा था कि जब एस्टर के ओरी हर बार अंदर एक ओवर कमिटमेंट दिखा रहे थे, वो कुछ खास अचीव करने पे असमर्थ रह रहे थे. अब उन्होंने हेस्ट तो उठा लिया, बट उनके पास माना नहीं है कुछ और एक्टिविटी करने की. बट फेथबियान इज मेकिंग अ कांस्टेंट प्रेशर ऑन द टॉप टियर 1 सो दैट बीस्ट कोच कुछ ना कुछ और प्लान ढूंढ सके. एग्जैक्टली. ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि इस गेम का मैक्रो भी यहाँ से कैसे जाने वाला है. बिकॉज इवन दो जैसा आप नज़र डालें उस किल काउंटर पे, किल्स के मामले में बीस्ट कोर्स दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स. गैंग्स अच्छे खासे आ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली पिक्स निकालते हुए नज़र आ रहे हैं. लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि PSG.LGD के दिमाग में बस एक ही ख्याल है, ऑब्जेक्टिव्स 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 ऑब्जेक्टिव्स. बस ये चल रहा है इन प्लेयर्स के दिमाग में, क्योंकि कोई अपनी लेन नहीं छोड़ रहा है अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी. आपके टीममेट्स इन दैट ऑफ लेन आर गेटिंग गैंग्ड, आपकी ड्राव रेंजर परेशान हो रही है, तो आप थोड़ा सा तो वो हेल्प करने की कोशिश करेंगे. एंड दैट इज व्हाई आई थिंक द पेंगुलियर मूव. लेकिन टॉप लेन के जो प्लेयर थे वो टॉप लेन छोड़ के गए नहीं. फेथबियान जैसे क्रैट ने बोला, ही वाज स्टिल देयर. वेव्स पुश करे जा रहे थे. और देखिए इतनी बेहतरीन मैक्रो कंट्रोल की 11 मिनट पे पहला टावर तोड़ने में कामयाब. ये देखिए ना, अब यहाँ पर जो कैरी है वॉइड की अगर नेटवर्क देखते हैं तो वॉइड राइट नाउ सिटिंग ऑन 4th पोजीशन. टॉप पे कौन है यहाँ पर? स्टॉर्म स्पिरिट है, जो कि जस्ट बिकॉज विद द इंटेंस उन्होंने रो और स्टॉर्म के अंदर ये गैंग चल रहा है बेसिकली. स्टॉर्म के पास अच्छे गैंग्स हैं, सक्सेसफुल गैंग्स हैं. उन्होंने बॉटम में जितनी बार भी किया टॉप पे गया, ही मैनेज टू गेट किल्स. उसके बाद ड्रो रेंजर डिस्पाइट गिविंग द फर्स्ट ब्लड, अभी भी ड्रो सबसे ऊपर है. और स्वॉशबकल वाले जो हमारे पैंगो हैं, इवन ही इज डूइंग लिटिल ग्रेट. उसके बाद आते हैं 5th नंबर पे हमारे जडान, और उसके बाद ऑफलेनर देखिए विसाज. 500 गोल्ड का फर्क है उनको.
So, ये चीज़ आपको अभी नहीं बट थोड़ी देर में ज़रूर दिखेगी जब स्लाडार के पास एक इनिशियल ब्लिंक आ जाएगा और विसाज को मारने का एक प्राइम एग्जांपल, एक प्राइम तरीका होता है कि आप विसाज के आर्मर के साथ खिलवाड़ करते हैं। एंड डिड यू सी दैट नॉर्मल एक 32 ही लगी बट ये देखिए स्वॉश बकल मारा, अगर वो डिसार्म हो जाते तो फर्क पड़ सकता था बट येस दिस स्टॉर्म गॉट साइलेंस्ड। ये जो नथिंग टू से ने यहाँ पर शील्ड क्रैश कनेक्ट करा है, इट वाज वेरी नीडेड। ऑल्दो दे गॉट द कोर 3 एंड पोजीशन 5 बट रो रेंजर इज इन वेरी ग्रेट डेंजर। रो रेंजर पिक ऑफ हो चुके हैं बट दिस टूमस्टोन इज नॉट गेटिंग एनी गुड रिजल्ट बट नथिंग टू से अभी भी स्वॉश बकल मारकर पूरा ट्राई कर रहे हैं बट ये बार टाइम वॉक बहुत ज्यादा डैमेज ऑलरेडी इन्फेक्ट करवा चुके हैं। 20 कोर्स की रोटेशन अच्छी थी, लॉस देयर मिड बट वहीं पर PSG लॉस 2 कोर्स, कोर 3 एंड कोर 1। वेल अब ये देखना होगा कि यहाँ से आगे का गेम किस टीम के फेवर में जाता है। जैसी थोड़ी देर पहले हम ड्रॉ रेंजर की बात कर रहे थे, क्रैश आई थिंक आमे को 3 बारी पिक ऑफ किया गया लेनिंग फेज के दौरान एंड ही स्टिल मैनेजिंग टू हिट दैट नंबर 1 पोजीशन फार्मिंग के मामले में, वो गोल्ड जनरेशन के मामले में। साथ ही साथ मिड लेन पे अभी जो स्कर्मिश हमें नजर आया, आई थिंक ये खत्म नहीं हुई है कॉज री एंगेज करती हुई नजर आएगी PSG.LGD एक ऐसे मोमेंट पे जहां बीस्ट कोच ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड दे मैनेज टू गेट अ पिक बैक फॉर आमे ऑन द ड्रॉ रेंजर। एक बार फिर से प्रोपेल करते हुए अपने मेन कैरी को टू द फर्स्ट पोजीशन इन नेटवर्क। When the gang started, it was first of all it was a chain disable। सबसे पहले ड्रो रेंजर का साइलेंस आया, जब साइलेंस हटने वाला था Void got stunned। The only viable thing I can see here is कि वहाँ पर शायद से एक क्लोज रेंज सेक्रेड एरो पड़ा और उस एरो की टाइमिंग पर स्वॉश बकल की वजह से दिस वॉइड हैड टू गो द पवेलियन साइड। अब देखिए यहाँ पे स्टैक भी हो रहा है, इसका मतलब जो मल्टी शॉट है ड्रो की जो थर्ड स्किल है उसके वजह से ड्रो विल बी गोइंग फॉर द फ्लैश फॉर्म और ऑलरेडी उन्होंने देखिए एडवांटेज बनाना चालू कर दिया। 6000 की नेट पर टच कर लिए एंड सामने है 4 रेंज क्रीप्स। कोई क्रीप यहाँ पे नहीं छोड़ा जाएगा, सबको बराबर लास्ट टाइमिंग पे हिट करके एक अच्छा फार्म की शुरुआत कर दी जाएगी। उनके पास अभी देखिए क्या क्या आ चुका है, उनके पास पावर थ्रेड है, उनके पास रेड बैंड है, उनके पास ड्रैगन लैंस है, उनके पास फाल्कन ब्लेड है, उनके पास मैजिक बॉन्ड है। विद इन 14 मिनट्स अगर इस ड्रो की प्रोग्रेशन नहीं रोकी देन बहुत बड़ा नाइटमेयर यहाँ पर 20 कोच बन सकता है बिकॉज अनटिल दे गेट BKB साइलेंस का कोई जुगाड़ नहीं है, साइलेंस का कोई हिसाब नहीं है। दिस वॉइड नीड्स टू एट BKB और मांटा, तभी इस साइलेंस से वो बच पाएंगे और उस साइलेंस की टाइमिंग इतनी काफ़ी होती है जिससे कि वो आराम से किसी भी प्लेयर को यहाँ पर टेक डाउन कर सकते हैं। अब उन्होंने एक प्लेयर को स्पॉट किया, दैट इज जो भी है उनको यहाँ पे क्या शील्ड क्रैश देखिए कितना डैमेज यहाँ पे इन्फ्लिक्ट करा, कुछ खास ही क्या स्वॉश बकल शील्ड क्रैश सेक्रेड एरो एंड स्टार स्टॉर्म, ये 4 स्पेल यूज हुए। कोई फिजिकल अटैक करने की जरूरत नहीं पड़ी उससे पहले, दे सिक्योर अ नाइस फ्रैग फॉर देमसेल्फ। अब ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, ऑल्दो दे हैव मोर किल्स बट नेटवर्क का फर्क आ चुका है 1000 का। अब ये गलतियां चलती रहेगी, नेटवर्क ज्यादा आ जाएगा, टावर्स भी उनके फेवर में चल रहे हैं बिकॉज उन्होंने टियर 1 ले लिया और यहाँ पर अभी तक आई डोंट सी कि कोई टावर उन्होंने लेने की कोशिश की है या नहीं की है। आई थिंक बीस्ट कोच ने एक टावर हटाया है I think yeah, it's the bottom. Yeah. It's equal trade off. फेथ बयान के लेने की वजह से they trade them off. But ड्रो ने ले लिया है यहाँ पे शार्ड। इसका मतलब हीलिंग काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ लिया, हाइपोथर्मिया। वेल बट देखना होगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी होती चली जाएगी बीस्ट कोच के लिए, क्योंकि जहाँ तक मैप प्रेजेंस मैप कंट्रोल की बात करें आई फील PSG.LGD बेटर कर रही है बीस्ट कोच से, बिकॉज टावर्स 2-1 चल रहे हैं अभी। 2 PSG.LGD ने लिए, एकमात्र टावर जो है वो बीस्ट कोच के पास आया। जब तक वो दूसरा टैरेट मिड लेन का नहीं आता तब तक मैप पे और जगह प्लेस बनाने की इनकी थोड़ी सी पोटेंशियल कम रहेगी। फिलहाल अगर नज़र डालें तो मैप के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा टॉप लेन में एक मुठभेड़ होने की चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरी की पूरी PSG.LGD की टीम यहाँ पे ग्रुप अप होकर बैठी हुई है और बस इंतजार कर रही है कि क्रीप वेव को थोड़ा और आगे पुश कराया जाए, इसे टावर के पास लाया जाए। मे बी दे ट्राई एंड पिक ऑफ अ फाइट। ओह इतना जल्दी स्नैपफायर पे एंगेज करने की कोशिश, बट स्नैपफायर इज वेरी स्लिपरी, कूद के चली गई दीवार के पास। अब देखिए जो स्लाडार के पास एक अच्छी शुरुआत मिली थी बट इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ ब्लिंक ही मेड पावर थ्रेड्स एंड MOM, बिकॉज ये MOM काफ़ी ज़्यादा डेडली प्रूव होता है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जंगल करने में मदद आता है, बिकॉज ब्लिंक लेना मतलब यू आर गोइंग फॉर गैंग्स, बट ये इंटरनेशनल है। यहाँ पर सारी टीम्स को पता है कि अगर स्लाडार मिसिंग है तो स्लाडार को काउंटर कैसे करना है। लेकिन स्लाडार भी थोड़ा सा भी के लिए ग्रीडी जा रहे हैं। अब ब्लिंक आएगा, पक्का आएगा, बट उससे पहले इको सेबर जैसे बेसिक आइटम आएंगे, बिकॉज यहाँ पर थर्ड स्किल मैक्स है, यहाँ पे अल्टी पे पॉइंट डल चुका है और ये MOM उनको ढेर सारी अटैक स्पीड जरूर दिलाएगा। गेम का एक स्लो फेज यहाँ पर शुरू होता हुआ एंड
आई गेस टीम फाइट की तरफ अब आगे बढ़ने की बारी आने वाली है। मिड पे पूरी की पूरी बीस्ट कोस्ट इस वक्त रीग्रुप, वेल पूरी तो नहीं, एक प्लेयर अभी भी टॉप लेन से रोटेट करके रिवर की तरफ आ रहे हैं। मिड टैरेट लेने की पूरी कोशिश यहाँ पे करी जाएगी बीस्ट कोस्ट के द्वारा। जैसे पहले बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपको दूसरी लेन्स में प्लेस बनाने हैं तो मिड पे क्रीप वेव पुश करते रहना बिकम्स इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा आप अगर ऑपोजिशन को पीछे धकेलें, आप दूसरी लेन पे स्प्लिट पुश के लिए जा सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस प्लस रॉश करने से पहले तो नीड टू मेक श्योर कि PSG/LGD के प्लेयर्स रेडिएंट साइड जंगल के अंदर ही रहें। आई एम स्टिल जस्ट लुकिंग एट दैट नेटवर्थ। ये ड्राउ का जो परफॉर्मेंस है आमे का बहुत इंप्रेसिव है। क्रैट, ये गोल्ड जनरेशन, दिस इज समथिंग एल्स। बट अभी भी नेटवर्थ के अंदर आई कैन फील सम चेंज यहाँ पे मिडास के वजह से जो एडवांटेज वॉइड को मिल रही है। एंड वॉइड पे फार्म आना मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे PSG की हो सकती है, बिकॉज वंस यू गेट द शार्ट एंड सेप्टर, इग्नोर सेप्टर पर शार्ट की वजह से आपके पास जो टाइम वॉक है उसकी बहुत बड़ी रेंज आ जाती है। 20 लेवल पे आपको क्रोनोसर में अटैक स्पीड भी मिल जाती है। सो दिस इज एवरीथिंग गिवन फॉर वॉइड और दे हैव टू डू इट नाइसली एंड जेंटली। जल्दी करना पड़ेगा, बट यहाँ पे देखिए दैट हील, दैट बैश, दैट वाज टू मच फॉर दैट पुअर एन्चेंट्रेस टू हैंडल एंड सफर। एक बार आपके कोरिजर फेज आ जाए, प्लस यहाँ पे MOM था जो बहुत मजबूत चीज़ थी यहाँ पे उनको गेम से बाहर निकालने के लिए। बट धीरे धीरे करके जो PSG है उस गेम के अंदर क्रॉल बैक कर रही है। ऑल्दो पोजीशन 5 यहाँ पर पिक ऑफ हो रहे हैं, बट देखिए वेद बयान पे चढ़ने की कोशिश, स्माइल ने अपनी पूरी माना यहाँ पर वेस्ट कर लिया जस्ट टू पिक हिम ऑफ, बट इंस्टेंटली उन्होंने TP कर अपने आप को एक सेफ पोजीशन में ले जाना पसंद करेंगे। आई थिंक दे गोइंग फॉर मिड, बट ओह माय गॉड, दैट्स समथिंग जिसका बिल्कुल भी किसी को अंदेशा नहीं होगा और किसी डायर को आइडिया भी नहीं है। यहाँ पे पहले रोशान तोड़ेंगे, उसके बाद ये देखिए अब अगली चीज़ अगले 4 से 2 अगले 1 सेकंड के अंदर क्या होगा। अब ये जो लगा रहा है यहाँ पे पेनल्टी लगा देगा, रोशान का आर्मर चला जाएगा एंड सी दैट डिप्लीशन स्पीड। इस वक्त पाँव के नीचे से ज़मीन हटी होगी, बट दैट क्रोनो एंड द मॉर्टिमर किस पीछे से बहुत ज़्यादा डैमेज आ रहा है एंड दिस इज लुकिंग वेरी बैड फॉर PSG। ऑल्दो दे लॉस्ट द पोजीशन 5 हीरो, बट क्या यहाँ पर नथिंग टू से का रोलिंग थंडर कुछ इंपैक्ट डाल सकता है, बट उन्होंने इंस्टेंटली रोलिंग थंडर को कैंसिल किया एंड स्वॉशबकल मारकर कुछ इंपैक्ट डालने की कोशिश करे, बट नथिंग टू से। He was in a very bad position and Smile punish him hard. Well, C-Smile का punish तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, but I think अगर इनको ड्राउ का पिक मिल जाए तो बात कुछ और ही होने वाली है इस फाइट के अंदर। कॉज अगर वो एजेस इतनी जल्दी वेस्ट करा दी तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदा बीस को उसको मिल सकता है। देयर इट इज, ड्राउ रेंजर गोइंग डाउन। वापस रिस्पॉन तो होंगे पूरी HP के साथ, पूरी माना के साथ, लेकिन इनको जिंदा कौन ही रहने देना चाहता है क्रैट एट दिस पॉइंट। एंड देयर गोज द एजेस। अब ये देखिए विदाउट एनी इम्पैक्ट बाय वॉइड और नथिंग टू से, एक स्टॉर्म स्पिरिट दे लिटरली टुक डाउन ड्रो। इस ड्रो को मारना बहुत ज़रूरी था एंड जो एजेस का बफ मिला था वो टोटली अपोजिट हो गया। बट नो डाउट यहाँ पर क्रोनो एंड मॉर्टिमर किस का जो कॉम्बो था, इट वाज लिटरली लाइफ सेविंग। वेरी नाइस। एंड मैं जिस स्पीड से यहाँ पे ये फेसलेस वॉइड ने एंगेज किया सीधा रोशान खत्म होने के बाद, मैं वो चीज़ तो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सो दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। बीस्ट कोर्स टीम फाइट तो है, अब टीम फाइट तो है बिकॉज क्रोनो के अंदर जो मेजॉरिटी डैमेज खाने वाले प्लेयर थे वो थे स्लाडार एंड अनडाइंग जी। अब अनडाइंग का वहाँ पे बच्चा पॉसिबल ही था, अनडाइंग तो फिर भी स्पॉन करके आगे थे। बट ये देखिए दिस स्टॉर्म स्पिरिट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ न्यूसेंस इन द सर्वर राइट नाउ। उन्होंने साइलेंस कर दिया, बट दिस इज द परफेक्ट टाइम आई थिंक। अगर यहाँ पे ओके ये जो 4 स्टाफ आया है इंचैंटर्स की तरफ से, इट इज रियली वर्थ इट बिकॉज यहाँ पर एक सीक्रेट एरो भी कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर इंचैंटर्स को बचाना इज इम्पॉसिबल। द गैंग वॉज एग्जीक्यूटेड नाइसली, बट पीछे जो टीम सपोर्ट आया जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसकी वजह से अभी ड्रो जिंदा है। बिकॉज ड्रो ऑलरेडी लॉस्ट लाइक ऑलमोस्ट 40-50% HP। थोड़ा सेकंड कुछ सेकंड और लगते काफ़ी ड्रो को भी एलिमिनेट कर देते। बट ये देखिए साज के पास भी अब धीरे धीरे आइटम्स आ चुके हैं और अब दे आर ऑल सेट टू ड्रो। आइटम्स धीरे धीरे करके बिल्ड हो ही जाएंगे, लेकिन अभी जो चीज़ बिल्ड करनी है वो है प्रेशर ऑन PSG/LGD। वेल इफ़ यू आर बीस्ट कोच दैट इज
एन्चेंट्रेस की तरफ से भी डैमेज आउटपुट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें नज़र आ रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो जो ग्राफ तुमने देखे थे 8.1k डैमेज अप अंटिल नाउ साइड ऑफ द गेम, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या ये चीज़ कंटिन्यू कर पाएंगे और इनफैक्ट करेंगे तो कितनी देर तक करेंगे। थोड़ी देर में जो PSG-LGD के जो हीरोज़ हैं they will also start hitting as hard as Beast Coast is right now. बिकॉज अभी PSG जो हमारी PSG-LGD है उनके पास कुछ वो स्टार्टिंग के जो आइटम्स होते हैं ना, अभी स्लडार का ब्लिंक वगैरह आ जाए एक बार, स्लडार पे ब्लिंक आता है एक बार, उसके बाद जो उनकी मोबिलिटी में फ़र्क आएगा, काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। देखिए 22 मिनट हुए, MOM है, उनके पास BK भी है और अब उनके पास 2000 गोल्ड भी है। दिस स्लडार इज फार्मिंग लाइक एनीथिंग। आई एम वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज ही इज लिटरली गिविंग टक्कर गेम चैलेंजेस टू द मिड हीरोज, बिकॉज मिड हीरो का भी काफ़ी जल्दी फार्म होता है और उनका फार्म बेटर है, नथिंग टू से। ये स्लडार एक बहुत बड़ी न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, स्पेशली फॉर द स्टॉर्म स्पिरिट एंड ऑल, बिकॉज एक बार अगर उनका माना खत्म हो जाता है देन विद BKB एंड MOM स्लडार एक अच्छा इम्पैक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। वॉइड का क्रोनो भी आ गया, मिडास, मेलस्टॉर्म, 2 और पावर थ्रेड्स, 3 चीज़ें उनके पास जो उनको अटैक स्पीड दे रही है। अब देखना कैसे ये इनिशिएट करेंगे। वाई को ध्यान देना पड़ेगा, जो टूमस्टोन की प्लेसमेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाली है। ये देखिए, ओके साइलेंस की जरूरत, अगर ये साइलेंस करते हैं फ़ायदा पड़ सकता है, बट येस BKB क्या यहाँ पे वॉइड क्रोनो यूज़ करने वाले हैं। BKB लगाया उन्होंने यहाँ पर अनडाइंग के लिए। आई थिंक क्रोनो कुछ ज़्यादा एक बहुत बड़ी पेमेंट होगी उस अनडाइंग को मारने के लिए, बट इसके आगे क्या, अब क्या करेंगे। स्लडार अपना MOM और के काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने की कोशिश, अब बारी है विसाज की, बट विसाज को डैमेज पड़ ही नहीं रहे। यहाँ पे जो मल्टी शॉट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, बट ड्रो एंड विसाज दोनों गेम से हो चुके हैं बाहर। कोर 1 एंड कोर 3, इट्स टाइम टू हैव अ लिटिल विजिट टू द फैमिलियर्स, जो विसाज कहते हैं काफ़ी ज़्यादा गोल्ड भी देते हैं। नथिंग टू से का जो स्वॉशबकल एंड ब्लिंक, दीज 2 आइटम्स giving lot of impact right now in the game, but बाकी सारे पे बीस्ट कोस्ट के वो इंस्टेंटली फॉल बैक कर, उन्हें पता था कि उस जगह पे फाइट लेने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जो सबसे बड़ा अल्टीमेट उनके पास है क्रोनो, वो पोजीशन 5 को मारने के लिए लग गया है। उसको उन लोगों को यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्रोनो है वो कुछ भी कर एटलीस्ट बड़े कोर्स को मार पाए, जैसे कि स्टॉर्म, जैसे कि ड्रो, इन प्लेयर्स को मारेंगे देन ज़्यादा फायदा अच्छा लगेगा। आई थिंक कुछ भी करके स्टॉर्म और ड्रो को तो आपको निकालने की पूरी से पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी देर तक ये ड्रो और स्टॉर्म स्पिरिट फार्म करते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली है। वेल फिलहाल अगर बात करें स्टॉर्म स्पिरिट और फेसलेस वॉइड, सॉरी, तो बढ़िया कर रहा है अपने लिए। ड्रो को आपको बाहर निकालना है, स्लडार को स्लो डाउन करना है किसी तरह से। एंड फिलहाल अगर बात करें विस्पर ऑन दैट विसाज, अभी भी पूरी कोशिश जारी, थोड़े और इम्पोर्टेंट आइटम्स अपने लिए बनाना चाहेंगे। एंड आई थिंक जिस तरह से आफ्टर द वे द अर्ली गेम हैपेंड, स्टॉर्म स्पिरिट का टर्न अराउंड जो हमको देखने को मिला, दैट हैज़ बीन वेरी इंप्रेसिव। और PSG-LGD की साइड से बात करें, वो पैंगोलियर परफॉर्मेंस, इट इज़ ऑलवेज गुड टू सी। हाँ, ये बात तो मैं मानूंगा। नथिंग टू से। विस्पर का जो विसाज चल रहा है, नो डाउट इज प्लेइंग वेरी गुड, बट अगर ये विसाज का गेम प्ले एग्जीक्यूट नहीं होता है एंड ही कुडंट मेक हिज टीम विन, देन अगले में तो मार्स आ रहा है। एंड ही इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। विसाज, why do you feel like this? Because I'm scared of the Pangolier. Last time बहुत deadly हो गए थे। नो डाउट ये पैंगो है, बट विसाज की भी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। इस वक्त विसाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि एक फ्लूक एरो था जो उनको आके लग गया था और वो गैंग पे लिटरली 4 से 5 सेकंड AFK थे, उसके वजह से उनको बहुत कुछ डैमेज को टैंक करना पड़ा एंड ही गॉट मेल्टेड डाउन। बट ड्रो ने भी अब यहाँ पे BKB ले लिया, इसका मतलब जो डर अब स्टॉर्म का था ड्रो पे, वो अब यहाँ पे खत्म हो चुका है। अनटिल अनलेस वो BKB खत्म होने के बाद स्टॉर्म उनको पकड़ेंगे तो बात अलग है, बट उससे पहले ये BKB उनको बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन चलिए देखते हैं क्या ये सेफ्टी का कुछ वैल्यू रहने वाला है। वन साइडेड शुरुआत हुई थी बीस्ट कोस्ट के लिए। आई नो जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को लगेगा क्या कह दिया, बीस्ट कोस्ट वन साइडेड स्टार्ट, PSG इज द बिगर नेम, बट यस बीस्ट कोस्ट ने अर्ली गेम डोमिनेट किया। मिड गेम की तरफ अब हम ट्रांजिशन कर चुके हैं काफ़ी अच्छे खासे तरीके से, और यहाँ पे PSG-LGD का बोलबाला बहुत ही बेहतरीन नज़र आता है। आमिर ने जो जितना टाइम स्पेंड किया अर्ली गेम में, इवन दो ही डाइड लाइक 3-4 टाइम्स कॉन्स्टेंटली बैक टू बैक मरे थे, फिर भी वापस आके अपनी फार्मिंग इतनी बेहतरीन तरीके से मेंटेन करी दैट इज सिटिंग ऑन द सेकंड पोजीशन, और वहाँ पे काफ़ी कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहे हैं। कांस्टेंट गोल्ड आना मतलब आपके आइटम्स जो हैं वो काफ़ी जल्दी आएंगे, और क्रैट जैसा बार बार बोले जा रहे हैं, वो फेसलेस वॉइड के आइटम्स आए
उसके बाद तो बहुत ज़्यादा पिटाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो आमे इज द वन हु इज ट्राइंग टू कीप अप, बट लुक एट दैट, एक बहुत ही अननेसेसरी एंगेजमेंट यहाँ पे आता हुआ बीस्ट कोच की तरफ से. एंड वेल नतीजा ये हो सकता है कि थोड़े बहुत प्लेयर्स से इनको हाथ खोना पड़े इन दिस पर्टिकुलर फाइट. वो एन्चेंट्रेस जो थी टेकन एक्सट्रीमली लो बट स्टिल मैनेजिंग टू सर्वाइव. और स्टॉर्म स्पिरिट का एक और एंगेजमेंट यहाँ पे तो एक इजी पिक मिल ही सकता है. Tango go down. Good boy. Oh, BKB. मैं क्या नहीं run away. Yeah, he can, cause वहाँ पे जो उनके पास माना है वो खत्म हो चुके, बट बात करने की बात ही नहीं, cause यहाँ पर nothing to say, pick off हो गए, undying pick off हो गए थे, and they got snap fire. जी. अब ये वॉइड का जो क्रोनो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल रहने वाला है पूरी थ्रू आउट द गेम, बिकॉज एवरी टाइम ये वॉइड के पास क्रोनो है, ड्रो विल बी फीलिंग थ्रेटन और उनको उस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा. बिकॉज अभी वॉइड के पास डैमेज नहीं था तो वो नहीं मार पाए. जब थोड़ी देर में डैमेज आ जाएगा, ड्रो मतलब हर बार यू कैन होप कि ड्रो टारगेट होने वाली है. डेफिनेटली. एंड ड्रो को टारगेट करना भी चाहिए. मैं तो बोलूँगा जितना टारगेट कर सकते हो करो. वेल 5 प्लेयर्स, 5 स्मोक करके आगे भागते हुए. सी स्माइल को ऑफ गार्ड पकड़ा गया है. एक ही झटके में HP बार आधा कर दिया, लेकिन स्टॉर्म स्पिरिट फिसल के चले गए उनके हाथ में. अगर वो कुकी नहीं आती देन वहाँ पे कोई सीन ही नहीं था कि वो बच पाते. बट ये देखें विसाज को उन्होंने यहाँ पे खत्म कर दिया और बाकी के जो सपोर्ट्स है एक एक करके यहाँ पे डिप्लीट हो चुके हैं. They can't survive this amount of damage because अगर स्टार्टार का बैश पड़ता है और पीछे से ड्रो रेंजर भी आ जाती है, no, there is no chance. और nothing to say तो है ही, जो इस वक्त इतना डिसएंगेज कर रहे हैं सबको. 3 हिट्स में पूरी वेव क्लियर हुई है. मल्टी शॉट की खासियत ही यही है. ड्रो रेंजर को अगर आप स्पेस दोगे then this you should expect such kind of activity. और I think I saw someone like who is going for that again scepter. स्नैपफायर को बचाना I think it's not possible, but ये जो स्टॉर्म स्पिरिट है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीममेट को बचा के चला जाएगा. बट फेमिलर के जो चेन स्टन से was able to save that snapfire. बट अभी भी 2 प्लेयर मरे हुए, 8 और 3 सेकंड के अंदर आने वाले. बट जब तक वो आएंगे I think it will be too late, बिकॉज जो बाकी के डायर हैं they are already on the other side of the map. और जब तक वो रोशान तक ट्रैवल करेंगे they will be losing this opportunity to get that Aegis of Immortality. और यहाँ पर आमे को मिल चुका है रोशान और शार्ड उठाया है जिंक्यू ने. तो चलिए देखते हैं रॉश आने के बाद क्या आगे का प्रोग्रेशन रहेगा. यहाँ पे आमे को जो एजिस मिला है इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर गलती से भी वो स्टॉर्म स्पिरिट आमे के ऊपर हमला बोलते हैं और फेसलेस वॉइड मैनेज टू कीप दी सपोर्ट्स अवे फ्रॉम हिम, तो आई थिंक दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी इफ आमे इज आउट ऑफ दैट फाइट, क्योंकि डैमेज आउटपुट जो है इट इज़ इनसेन राइट नाउ. लेकिन अब रॉश को ट्रेड किया गया था टियर 2 के लिए. मैप पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर उसकी वजह से यहाँ पे मिला है बीस्ट कोस्ट को. मिड लेन का टियर 2 बस बाकी बचा है PSG.LGD का. अपार्ट फ्रॉम दैट टॉप पूरी लेन खाली, बॉटम पूरी लेन खाली. स्टार्टार के पास ऑलरेडी पॉइंट बूस्टर है और उनके पास 2900 गोल्ड भी है. इसका मतलब सेप्टर आ जाएगा. सेप्टर के बाद दिस स्टार्टार दैट डैमेज एक बार कोरोजा वेस्ट के बाद तो इट्स नॉट इजी. आई डोंट नो व्हाई फेट बियॉन्ड पॉप्ड हिज वीकली, ही डजंट हैव माना, वो एक इम्पैक्ट कैसे डाल पाते. बट ये जो फेसलेस वॉइड हैं उन्होंने मांटा बना और ये हैड इल्यूजन रून, बट ड्रो ने भी यहाँ पे ब्लिंक ले लिया. well, मैं अभी क्रैटिक सिर्फ मेजर टीम फाइट का इंतजार कर रहा हूँ. I want to see these two teams collide, क्योंकि अब मिड गेम से लेट गेम जाने का वक्त आ चुका है. एंड लेट गेम्स मींस योर की आइटम्स आर देयर, लाइक एटलीस्ट शुरुआत हो. हाँ 30 मिनट को आप मिड गेम बोल सकते हो.
जैसे 40 होगा मतलब लेट गेम की शुरुआत हो जाएगी एंड आइटम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे एंड की आइटम कुछ अलग ही होते हैं जैसे ड्रोक रे बटर हो गया सटानिक हो गया वॉइड लिबिविन एमकेवी डेडलिस्ट और मेरा एक सटानिक जैसे आइटम ये एडिशन ऐड होने लग जाएंगे और उसके बाद ये प्लेयर्स का जो पोटेंशियल होता है फिर अलग आसमान में दिखता है और ये कुछ प्लेयर्स होते हैं जो लेट गेम के लिए बने होते हैं जी अभी तो ट्रांजिशन पीरियड ही है इस टाइम पे आप थोड़ा सा प्रेशर गेन करने की कोशिश करेंगे सेटअप करने की कोशिश करेंगे अपने लेट गेम टीम फाइट्स के लिए कि सामने वालों के बेस के अगर पास आप उनको मारते हैं दैट मीन्स आपको टरेट आराम से मिल जाएंगे बट फिलहाल टियर 2 यहाँ पे खाने की कोशिश एक बार फिर से PSG.LGD के ताकि थोड़ा इवन आउट कर दे सिचुएशन को इन्होंने अपने दोनों टियर 2 खो दिए हैं ऑन टॉप एंड बॉट जैसे पहले भी मेंशन किया था बट ट्रेड में देखिए यहाँ पे मिड टियर 2 लिया जा रहा है दैट मीन्स अब सीधा जो हमला होगा बीच कोच का वो होगा टियर 3 टरेट्स के ऊपर स्टॉर्म स्पिरिट की एंट्री पूरी की पूरी टीम कोलैप्स करते हुए फेथ बयान के ऊपर और जाए तो जाए कहाँ वेल टीममेट्स तो आ चुके हैं बट एक अच्छा क्रोनो यहाँ पे पड़ता हुआ जिस मेकिंग श्योर दैट वेल अ लॉट ऑफ की प्लेयर्स आर गोइंग टू बी आउट ड्राव अभी भी बची हुई हैं इन दैट फाइट एजेस के साथ द पैंगोलियर इज देयर अलोंग विद द मिराना एज वेल 2 प्लेयर्स का नुकसान होता हुआ PSG.LGD को बीस्ट कोच का एक बहुत ही अच्छा गैंग काफी अच्छा था बट क्रोनो के अंदर आई डोंट नो व्हाई he is always targeting position 5 नफरत है उनसे पता नहीं क्यों अनडाइंग ठीक है इट्स इंपॉर्टेंट बट अनडाइंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है टूमस्टोन को मारने के लिए उनके पास है लिल श्रेडर is more than enough to take down the tombstone and I feel bad for Faith Bian because Faith Bian wanted to stun विसाज ने उनको stun slow करा और पीछे से स्टॉर्म भी आ गए so he was literally a patty in a sandwich दोनों तरफ ब्रेड उनको पुश कर रहे थे एंड ही गॉट लिटरली सैंडविच और उसकी वजह से वो अपना एक आउटपुट नहीं दे पाए बट जैसी टीम उनको सपोर्ट करने आगे गई दे गॉट क्रोनो एंड दे गॉट एलिमिनेटेड टीम में स्लाडार एंड अंडाई की पिक ऑफ हुए हैं ज़्यादा मेजॉरिटी जैसे कोर 1 एंड 2 जो नथिंग टू से एंड आमे हैं वो अभी भी बरकरार टिके हुए एंड आई थिंक इट्स जिंक्यू जो अभी it's enchantress जो अभी फार्म कर रहे हैं यहाँ पे अगर किसी ने भी किसी को पकड़ लिया ओके यहाँ पे स्पॉट करा ओके दे आर गोइंग फॉर दैट no they should have स्लाडार को अपना जो अटैक नंबर 4 है वो चार्ज करके जाना चाहिए तभी जाकर इट्स अ गुड थिंग बट वो चैनल कर रहे हैं उन्होंने थोड़ा सा लेट कर दिया थोड़ा सा उनको देखना चाहिए था एंड अगर उन्होंने पहले उनको कुकी मारते हुए देखा होता तो बेटर टारगेट वही थे बिकॉज स्टॉर्म को पकड़ना इज इम्पॉसिबल इफ यू डोंट हैव अ सर्टेन स्टन अगर आपके पास है एक स्टन नहीं है एंड स्टॉर्म आपकी रीच में नहीं है देन आप स्टॉर्म को नहीं पकड़ सकते हो बिकॉज करना क्या है एक पोजीशन पे आ रही तो दबाना है उसके बाद तो ऑटोमेटिकली माना कि कॉस्ट पे आप पहुंच जाएंगे वेल आई मीन बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली बट मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा सैंडविचेस की बात ना कीजिए भूख लगी भूख तो है भूख है सुबह के I just had that protein bar. Thank you so much. You got me yesterday. And everyone, stop unhealthy carbs. Eat good, because nobody can afford to have a metabolism like Mr. Johnny. He's a nice guy, man. He's a fit guy, and people should be fit. Respect your body. Running totally healthy, man. Like I have seen your stamina. But your stamina performance, I have seen your stamina in every day, and people are fans. Notice me. Everybody is noticing you, brother. I love you, man. Nothing to say. He's a great talent, and I just wish him good luck, great luck. Smile as well. Great guy. Always smile. Why I'm a huge fan of Nothing to Say? Because my favorite player is Tinker. Recently, in the updated patch, Nothing to Say, Tinker का ना पूरा बेसिक हिला दिया. Tinker का फार्मिंग एलिमेंट था मार्च ऑफ मशीन्स थर्ड स्किल उन्होंने वो स्किल ही गेम से निकाल के बाहर फेंक दी. अगर आप टिंकर नहीं खेलते आपके 40 से 50,000 रुपए बच जाते मेरे ख्याल से. कैसे? आपने 4 से 5 कीबोर्ड खराब बाकी चीज़ें खराब करते हैं. मेरा ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज ओके यहाँ पे गैंग हो चुका है वोटेक्स लगाने की कोशिश. यहाँ पे सबसे पहला प्लेयर जो होगा अनडाइंग होगा बार बट स्लाडार को देखिए कितना ज्यादा डैमेज पड़ा है बट पीछे से बट क्रोनो के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 3 पेयर अपने आ चुके हैं बट यहाँ पर कोशिश करी टाइम बॉक्स मार के कोशिश करेंगे बट दे डोंट हैव डिटेक्शन दे डोंट हैव एनीथिंग. बट यहाँ पर अगर साइलेंस आता है देखिए साइलेंस इज लिटरली हर्टिंग दैट ओगर टोटम
लिटरली सेव स्नैपफायर लाइव, बट वो ज़्यादा देर बच नहीं पाएंगे। बट अब हो रही है चेजिंग, हल्की हल्की मीठी मीठी चेजिंग हो रही है। एंड दोज फ्रॉस्ट एरोज हाइपोथर्मिया की वजह से हीलिंग ऑफ है, स्टॉम्पिंग ऑफ हो गए। अब 2 प्लेयर बचे हैं, स्टन मारकर विसाज का भी टीपी कैंसिल कर दिया। आई थिंक इट्स अल्ट्रा किल, इट्स 4 किल्स फॉर टीम PSG। और LGD के जो आमे हैं, ही हैड सम क्रेजी पोजिशनिंग, बट इस गैंग में जीतने का एक बहुत बड़ा क्रेडिट मैं देना चाहूंगा यहाँ पर हमारे K1 को, जिन्होंने बहुत ही लाजवाब क्रोनो मारा, जिसके अंदर 3 अपने प्लेयर थे। और मतलब ऐसा होता है कि फेस्टेस वर्ड कहता है कि मैं क्रोनो मारूंगा, यू गाइस कैन अटैक फ्रॉम आउटसाइड। उन्होंने कहा ब्रदर हम I want to see why that desperate chrono was there. Could have held this chrono will be haunting him a lot. मतलब यहाँ पे PSG.LGD वाले हंस रहे होंगे कि क्या किया भैया ने। हाँ मैं शॉक में चलेगा, कहते क्यों? Jin Q is the man who's always smiling, so he was still smiling, but yeah, एक बड़ा ब्लंडर जो कि ट्रांजिशन कर सकता है PSG.LGD के लिए एक फ्री मिड टियर 2 में। एंड मिड टियर 2 अगर आ जाता है PSG.LGD के पास, तो वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। पहले रोशान पे किसी ने कंटेस्ट नहीं किया, दूसरे पे तो बीस्ट कोस्ट को बहुत ही ज़्यादा पीछे रह के खेलना पड़ेगा अगर ऐसे टीम फाइट जाएंगी तो। वॉइड के पास नेटवर्थ एडवांटेज देखिए, ऑलमोस्ट 2000 गोल्ड का नेटवर्थ एडवांटेज है उनके पास। ही इज टॉपिंग द चार्ट्स, बट वो चीज़ दिख नहीं रही है बिकॉज क्रोनो इज अ हेवी कूलडाउन स्किल, प्लस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मतलब कहते हैं ना एक ऐसी शक्ति है, इट्स अ ब्रह्मास्त्र, अगर गलत हाथों में लग जाए तो दुनिया खत्म भी हो सकती है। आप लाइट बंद कर दोगे सामने वाले। हाँ, अगर आपने अच्छा क्रोनो मारा, आप सोच के देखिए ना, अगर आपने अच्छा क्रोनो मारा आपको क्या क्या सपोर्ट दे सकता है। आपको पीछे से मॉर्टिमर किस है, यहाँ पे एन्चेंटस के इम्पीटस वाले शॉट्स आ गए, उसके बाद विसाज भी डैमेज देने वाले, बहुत सारी चीजें हो सकती है। एंड हु इज सेइंग कि आपको क्रोनो में 5 मारने हैं, आप इंपैक्टफुल प्लेयर्स को मार दो। आप ड्राव और स्लडार पकड़िए बस, टारगेट ड्राव और मे बी नथिंग टू से, जो आपको बहुत ज्यादा इस वक्त थ्रेटनिंग लग रहा है, आपकी टीम के लिए थ्रेटनिंग है जी, ठीक है। एंड ये इज गुड टू गो, आपका कैरी का काम खत्म। बट अगर आप अपनी टीम को ही क्रोनो में डाल लोगे, जो कि एक पैनिक डिसीजन था वहां पर, तो फिर तो भाई यहाँ पे बात नहीं है। दिस इज इंटरनेशनल, यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश है, बट यहाँ पे अच्छा गैंग करने की कोशिश। बट यहाँ पे देखिए सरदार की एचपी कितनी ज्यादा कम है। आई थिंक 1 मोर स्टन, बट दैट्स स्टन ऑन स्टॉर्म स्पिरिट, उनके पास मानो तो बची है बट एचपी नहीं है। 1 मोर शॉट विल बी एनफ, बट ये जो एरो खाया है मेरे ख्याल से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। बट इनको यहाँ गुड क्रोनो, दैट इज अ गुड क्रोनो। नाउ 3 प्लेयर्स पकड़े सामने वाली टीम के, और अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे PSG.LGD के। एक एक करके सब प्लेयर्स हमको फिनिश ऑफ होते हुए नजर आएंगे। फेथ बियान टू गो डाउन नेक्स्ट। 3 प्लेयर्स का नुकसान, आई थिंक पिछली फाइट का बदला ले लिया गया है। क्रैट K1 हैज रिडीम्ड हिमसेल्फ। ये बहुत बेहतरीन क्रोनो था यार। अरे अभी तो क्रोनो मारा था, कूलडाउन हटा लिया इन्होंने, आइदर उन्होंने रिफ्रेशर बनाए और टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है। बट जैसे जैसे आइटम प्रोग्रेशन होगी, जैसे अभी ड्रो के पास 2 स्लॉट है अभी जी, उनका जो ब्लिंक है वो एक तरीके से आपका स्विफ्ट ब्लिंक बन जाएगा, जिसके अंदर एक ईगल सॉन्ग ऐड होता है। हर बार फेथ बियान की पोजीशन देखिए, स्टन देखिए क्या बढ़िया स्टन था। एक और फटका लगता ना, स्टॉर्म यहाँ पे पिक ऑफ हो जाते। बट ये देखिए, ये स्टन खाया, वॉइड को डैमेज दे रहे हैं। एंड ओके, वो जो एरो का था, एरो का स्टन खत्म हुआ, उन्होंने मांटा और बीकेबी खोलकर ही जस्ट वेंट ऑन। उन्होंने सबसे पहले जिंक्यू को पिक ऑफ करा, उसके बाद दे वांटेड टू किल आमे, बट आमे को मारना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल ऑलरेडी हो चुका था। बट स्लाडार के साथ वो मैन फाइट कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ द अटैक स्पीड एंड द बैश। एंड फाइनली वेरी नाइस स्माइल। ओके, बट रोशान ले रहे हैं। रोशान के पास इस वक्त क्या आइटम होंगे? शार्ट तो होना चाहिए, साथ साथ रिफ्रेशर आने की भी चांसेस, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ थर्ड रोशान। यस, ये तीसरा थर्ड रोशान में शार्ट आता है, बट रिफ्रेशर के चांसेस चीज हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज। ओके, वॉइड गॉट रिफ्रेशर टू, नाउ दे हैव टू वरीड अबाउट द 2 क्रोनोस। बट यहाँ पे बैक टू बैक सपोर्ट आ रहा है। अब स्माइल ने सारी माना बंद कर लिया, पूरे गैंग ने ही विल मोर देन बी वेस्ट। बट एफआई की पोजीशन बहुत ज्यादा बुरी थी, यहाँ पे अनटाइम यहाँ पर गेम से बाहर। बट स्लाडार को अभी भी 13 सेकंड लगेंगे गेम के अंदर आने में। बट जिंक्यू के पास है यहाँ पर डी, बट दैट डी वोंट बी एनफ, बिकॉज यहाँ पर जो स्माइल है वो सीधा जैप करके आएंगे, वोटेक्स लगाएंगे, एंड दे मैनेज टू गेट 1 मोर फ्रैग। एंड दिस इज अ नाइस स्टॉर्म स्पिरिट। वो रीजन का बड़ी
प्यारा यूज़ कर रहे हैं। और उनके पास एक और बहुत प्यारा आइटम है जो पहली बार इस गेम में मैंने इस टूर्नामेंट में देखा है स्टॉर्म के बाद, दैट इज ऑर्किड ऑफ मेलेवोलेंस। जब भी आपको पता है कि सामने वाले का स्पेल्स बहुत ज़्यादा है, आप उसको साइलेंस करके मार सकते हो। लेट्स सपोज आपने 100% से मारना चालू किया, 70% कर दिया, बर्न डैमेज भी 10-15% पड़ता है जो कि इम्पैक्टफुल है। अब यहाँ पर 2 प्लेयर्स नहीं है एंड आई स्टिल थिंक दैट दे कैन डिफेंड, बट they need to be careful because इस वॉइड के पास है रिफ्रेशर। बीकेबी मार्टा थोड़ा पैसिव है वॉइड की, बट डैमेज की थोड़ी किल्लत होगी को 200 188 प्लस 81, इसका मतलब जो इनका टोटल डैमेज है 269 का राउंड होगा। और आई डोंट फील लाइक ये एक डिसीजन अच्छा होने वाला है, बट अनडाइंग जैसी टीपी करके आए दैट वॉर्ड एक्सट्रीम मे बी दे मस्ट बी सम वॉर्ड देयर, बट इट्स हार्ड। PSG लॉस्ट द फर्स्ट सेट ऑफ बैरक्स, इतना अच्छा लाइनअप और इतना सब कुछ होने के बावजूद जाएगा सेकंड बैरक्स भी जाएंगे ऐसा लग रहा है। They will try to defend it, but ये देखिए ना तो से रोलिंग थंडर ऑन करके आए, बट इस वॉइड को मारना आई डोंट थिंक इट्स इजी बिकॉज़ वॉइड वो बहुत ज्यादा फैट तो थे, बट क्रोजिव हेज एंड फ्रॉस्ट एरोज दे आर टू मच टू हैंडल। उन्होंने यहाँ पर डॉज करने की कोशिश तो करी है, बट आई डोंट थिंक कि ये ज्यादा फायदेमंद होगा। उन्होंने क्रोनो मारा, क्रोनो मारकर एक प्लेयर को तो कंफर्म कर दिया, दैट इज अनडाइंग। अनडाइंग का तो मजाक बना दिया। वाई का गेम इस वक्त बहुत ज्यादा कठिनाइयों के बीच में जा रहा है एंड जैसा जॉनी कह रहे थे कि यहाँ पर जो हमारी टीम है बीस्ट कोस्ट वो 2 साइड मेगा करने में सक्षम रहेगी। बीस्ट कोस्ट बीस्ट मोड जा चुकी है इस गेम के अंदर अब। एंड अभी सुबह मेरी और क्रैट की कॉन्वर्सेशन चल रही थी। मेरी एक थ्योरी थी, थ्योरी भी नहीं मतलब हाइपोथेसिस थी, इसका कोई ना सर है ना टांग है, मैं बस हवा में बातें कर रहा था, बट ऐसा लग रहा है क्रैट सच हो सकती है। आई नो आई एम स्पीकिंग स्टिल टू सून। No, like just अब ये जो 2 साइड मेगा कर रहे हैं, this is not a fluke गेम प्ले, this is something। हाँ गलती करी, we learn from it, उसके बाद भी हमने गलती नहीं करी। पहला क्रोनो खराब किया, उसके बाद जो 2-3 क्रोनो लगाए हैं, दिस इज ब्यूटीफुल। और अब वॉइड की जो आइटमाइजेशन है, ये वॉइड भले ही डैमेज ज़्यादा ना दे, बट स्काडी मांटा बीकेबी इस वॉइड को मारना आसान नहीं होगा। इस वॉइड को मारने के लिए आपको एक प्रॉपर चेन ऑफ स्टन्स चाहिए, तभी जाकर आप इस वॉइड को गेम से बाहर निकाल सकते हैं। बट फाइनली जो बीस्ट कोड है, दे डिसाइडेड कि बहुत महफिल जमा ली हमने टॉप एंड मिड में, अब इट्स टाइम टू टेक डाउन द बॉटम बैरक्स टू एंड दे वांट टू टेक फाइट। दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, बट नथिंग टू से। ही बॉट द आर्मर, ही बॉट द स्ट्रेंथ ब्लिंक जस्ट बिकॉज एक डैमेज होगा, स्लो कर सकता है, बट यू नेवर नो। बट वॉइड के पास वो सारी पावर्स है। अभी तक शार्ड नहीं लिया है स्टॉर्म ने, बट सेप्टर खा रखा है, सेप्टर उनको निशान के अंदर मिल चुका है। क्या ये यहाँ पर कुछ और कर पाएंगे? बट वहीं पर जो फेसलेस वॉइड है, ही इज ट्राइंग टू डॉज, बट ये रोलिंग थंडर का एक इम्पैक्ट नहीं ला के दिखा पा रहे, नथिंग टू से। बट वहाँ पे मॉर्टिमर किस यूज हो चुकी है, जो वॉइड का एक सबसे बड़ा बैकअप था। यहाँ पर K1 इज ट्राइंग कि वो टाइम वॉक को मार कर रिवर्स कर पाते, बिकॉज जब आप सेप्टर लेते हैं, सेप्टर से क्या होता है कि जब भी आप टाइम वॉक मारते हैं एक एरिया के अंदर सबको बैश पड़ता है, बट अगर आप शार्ड लेते हैं, शार्ड से एक नई स्किल आ जाती है। दे आर री-एंगेजिंग। स्टॉर्म स्पिरिट ने डाइव किया ताकि थोड़ा सा प्रेशर डालें एंड दे बीस्ट कोस्ट को ये टावर T3 जो है वो मिल जाए काफी आराम से। अब बैरक्स के ऊपर हमला बोल दिया गया है। बीस्ट कोस्ट दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। एक और क्रोनो डाला जाता है यहाँ पे जस्ट टू सी इफ पैंगोलियर को यहाँ पे पिक ऑफ किया जाएगा। ये एक मिस्टेक हो सकती है क्रैट, हल्का सा ओवर एक्सटेंशन एंड बीस्ट कोस्ट आई थिंक यहाँ पे काफी कुछ लूज करेगी इस फाइट में। यहाँ पे उन्होंने मेगा कर दिया, यहाँ पे मर भी जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है until they go just go for all in। बट एक एक करके यहाँ पे मुझे तो उल्टा दिखने वाला है कि जो रेडिएंट प्लेयर्स है वो डैमेज खा रहे हैं। यहाँ पे बाय बैक करके गोजिला भी वापस आ चुके हैं। फेसेस वॉइड अभी तक मुझे दिखे नहीं है, बट ही इज ट्राइंग फ्रॉम बैक कॉर्नर्स डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये आमे अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। अगर ये हाइपोथर्मिया काम करिए देन काफी ज्यादा नुकसान होगा और 1 मोर एरो विल बी एनफ एंड यस इट इज। जहां पर दोनों मेन कोड मर चुके हैं और स्नैप फायर का डाई बैक भी हो चुका है। PSG.LGD जो आमे हैं उनको डबल किल मिल चुके हैं। नाउ दे विल गो फॉर द डायरेक्ट पुश एंड दे विल बी गिविंग देयर बेस्ट शॉट, बिकॉज उनको पता है ये अकेला मौका है। F5 को पुश करने की जरूरत नहीं है, उनको डिफेंड करने की जरूरत है, क्योंकि जो आप मेगा क्रीप्स है दे आर नॉट हम्बल, दे आर नॉट सो यू नो इजी गोइंग। बहुत ज्यादा बेस डैमेज होता है, बहुत ज्यादा HP होती है। नॉर्मल की बाकायदा प्लेयर्स को वो डैमेज देकर गेम से बाहर निकाल सकते हैं अगर उनको एक अंदेशा हो जाए कि नीचे DD रोन है। दिस ड्रो कैन टेक डाउन होल टावर इन मैटर ऑफ सेकंड। बट एक बुरी खबर है यार, 20 कोट के हर प्लेयर के पास बायबैक। 20 कोट के हर प्लेयर के पास बायबैक, वेल 2 के पास नहीं है, बट
जो मेन है यहाँ पर। हाँ, मेन के पास है स्टॉर्म स्पिरिट, फेसलेस वॉइड के पास बायबैक है। PSG-LGD के लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कुछ भी करके इनको ये मिड बैरिक्स चाहिए और ये टियर 3 जो है इसको गायब करना है यहाँ से बिफोर बीस्ट कोस्ट कम्स बैक ऑनलाइन। बट ऑलरेडी देर हो गई, फेसलेस वॉइड बायबैक करके वापस आ चुके हैं गेम के अंदर। स्टॉर्म स्पिरिट करेंगे नहीं, कहते 15 सेकंड में वैसे ही आ जाऊंगा, क्या ही फर्क पड़ता है। वेल फर्क वैसे नहीं पड़ता, अब तो गेम GG होने वाला है थोड़ी देर के अंदर। PSG के लिए यहाँ पे बेस डिफेंड कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा, स्पेशली जिस हिसाब से यहाँ पे वो फेसलेस वॉइड का परफॉर्मेंस चला है इस गेम के अंदर। लास्ट फाइट में करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल से दिक्कत ये हो गई थी वो जो स्टॉर्म स्पिरिट का री एंगेजमेंट था, गोइंग इन पूरा फाउंटेन तक चले गए थे ऑलमोस्ट मारते मारते, और वहीं पे उनको पहले फिनिश ऑफ किया गया। फिर उनकी टीम के ऊपर PSG ने हमला बोला और आमे जितना स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। It was snap fire. I don't know what he was trying to do in fountain. उनको it was snap fire. Snap fire का पता नहीं मुझे। When did Storm Spirit die then? Storm Spirit की माना खत्म हो गई थी and वो स्लडार के हत्थे चढ़ गए थे। और स्लडार ने भी आइटम प्रोग्रेशन काफ़ी लाजवाब करी है। अब ये देखिए उनके पास स्वेबलिंग आ चुका है, उन्होंने डेसोलेटर बनाया। डेसोलेटर इज इम्पल्स बाय ट्रो रेंजर में कोई भी डेसो नहीं बनाता, बिकॉज एक तरीके से आपके फ्रॉस्ट एरो स्लो करे और डेसो उनका आर्मर कम कर रहा है। डेसो से अच्छा दिख रहा है टेकन एनीथिंग एल्स, मे बी अ बटर और अ डेडलेस, जिससे कि वो थोड़ी देर और अपना गेम प्ले अपने को सर्वाइवलिटी पे काम कर पाते। बट डेसो एक इम्पल्स बाय था, मे बी जस्ट टू ब्रेक टावर्स, जल्दी खत्म होता। बट रो एक और चीज़ बना रहे हैं, दैट आइटम इज इयॉन डिस्क। इसका मतलब जो सरप्राइज पुशेज आते हैं स्टॉर्म के, यस नेक्स्ट रॉश 9 to 11 मिनट्स के अंदर आएगा। अरे चीज़ छोड़ के गए थे। 500 रुपये का आप बेच सकते हैं चीज़, बट उस टाइम पे हाई इम्पल्सिव गेम होता है, आपको पता ही है, काफ़ी बार हो जाता है। हमारे इंटरनेशनल हिस्ट्री में भी हुआ है। 2013 के अंदर टीम का नाम था नियॉन या ऑरेंज ई स्पोर्ट, मूशी मिड खेल रहे थे और उनकी टीम की विन डेंजर थी KYXY, और उन्होंने प्रेशर के अंदर आकर एजेस डिनाई कर दी थी। आई रिमेंबर। और उस टूर्नामेंट के अंदर नावी वाज ऑल सेट टू बी एलिमिनेटेड, और नावी उस टाइम पर एक काम कर रही थी पज और चेन कॉम्बो, जो कि बहुत अनऑर्थोडॉक्स है एंड इट्स नॉट इजी टू पुल ऑफ, और वो कर दिया। बट जब वो एजेस डिनाई हुई तो वी सॉ द लिटिल यू नो फेरोशियस मूशी, जो KYXY को शायद से शूट भी करते थे उस गेम। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एजेस डिनाइल गेम बहुत ज़्यादा गेम से हाथ से बाहर हो गया। अगर आपके साथ कोई ऐसा गेम में करता है, आई एम प्रीटी श्योर आप उसको कैफे से बाहर फेंक देते। नहीं, मैं अच्छा कि जस्ट अ गेम, या तो PC ऑफ कर, जस्ट अ गेम। अभी मैं लाइव हूँ और मैं ऐसे आंसर नहीं ओके ये काफ़ी अच्छा इन्होंने एक अब जाके स्किल दिखाया कि अकेले जो विसाज है वही विसाज एंड स्लाडा द टू पीपल जिनके पास अगानिम शार्ट भी है जी, और साथ साथ ब्लेसिंग भी है जो कि वो यूज़ कर पा रहे हैं। बट गोजिरा ही नीड टू रियलाइज़ कि भाई थोड़ी लिमिट्स होती है सपोर्ट्स की, इतना आगे नहीं जा सकते, कैरी को क्रॉस ओवर नहीं कर सकते। और मज़े की बात देखिए, इट्स ऑलमोस्ट 50 मिनट्स इनटू द गेम एंड जो हमारे रेडियंट्स हैं दे नॉट फार्मिंग इनसाइड द द प्रीमिसेस, वो बाहर जाके फार्म कर रहे हैं। बट यहाँ पर अलग से शॉपिंग करने की गुस्ताखी करी थी अनडाइंग ने। वाई का गेम इतना अच्छा नहीं गया, अनडाइंग का प्रेजेंस लेन के अंदर इट वाज डिसेंट। उसके बाद जो पूरा गेम है ना वो आमे नथिंग टू से और स्लडार का ही रहा है। जिंक्यू ने भी अच्छी कोशिश तो करी है, बट कब तक करेंगे। बट यहाँ पर उन्होंने पोस्ट आउट करके भागने की कोशिश, आई थिंक बीके भी मारेंगे, बट उतने से पहले क्रोनो आया। बट इयॉन डिस्क का एक अच्छा खासा मैं बोल सकता हूँ डी बफ, बट इयॉन डिस्क के बावजूद भी यहाँ पर उन्होंने मारा। बट रिफ्रेशर ऑन करके ही इज गोइंग फॉर अ न्यू क्रोनो के अंदर दैट डैमेज वाज नॉट सफिशिएंट बिकॉज़ ड्रो रेंजर एक माना इंटेलिजेंस एजिलिटी हीरो है तो आर्मर तो होता है, बट उन्होंने चीज़ खाकर स्माइल ने अपने आप को फिर से माना से भर लिया। बट आई डोंट थिंक कि अब ये ड्रो ये संभालने लायक सिचुएशन रह चुकी है। क्रीप का डैमेज, प्लेयर्स का अनोइंगनेस, बट यहाँ पर क्रोनो लगे 2, रिफ्रेशर हुआ है यूज, अगले 1.5 मिनट कुछ भी नहीं है यहाँ पर 20 कोर्स के पास। तो अगर उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे देन दे कैन अचीव समथिंग मोर। बट मुझे लगता है नहीं कि अब इस गेम के अंदर PSG-LGD के लिए कुछ बचा है, बिकॉज यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्थ एडवांटेज है, बायबैक का जो स्टेटस है वो उनके फेवर में नहीं है, साथ साथ 2-2 मिनट तक नहीं है, और वहीं पर बायबैक का जो स्टेटस है वो उनके फेवर में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। मेरे को क्राइड एक चीज़ अभी भी समझ नहीं आई, हाउ इज आमे स्टिल अलाइव? आमे ड्रो खेल रहे हैं। ड्रो एक एजिलिटी हीरो होते हैं और उनके पास जो आइटम्स है वो उनकी एजिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। इस ड्रो को मारने के लिए आपको हैवी डैमेज आइटम चाहिए, जैसे कि डेडलेस या तो एनजीबी या तो डिवाइन।
और मे बी आप मैजिकली बर्स्ट कर सकते हो और टिंकर विद डे गन और एथरल कॉम्बो शायद होता। देखिए दो रेंजर पे चढ़ने की गुस्ताखी करे, बट आई डोंट नो स्टॉर्म को भी रियलाइज होता है कि क्या ये स्टॉर्म के पास इतना डैमेज है, बट कॉज ड्रो के पास आप एजिलिटी देखिए ना कितना है, मल्टी शॉट के अंदर भी दे हैव बीन डीलिंग लॉट ऑफ डैमेज। 7 सेकंड के लिए यहाँ पर स्नैप फायर को अफसोस अभी मरना पड़ेगा, गेम से बाहर है, बट रोशान किसी भी सेकंड आने वाला है। अगले 4 सेकंड के अंदर रोशान आएगा और उसके बाद हमको एक अलग दृश्य देखने को मिलेगा। जैसे ही वो रोशान पिट से बाहर गए, रोशान स्पॉन होता है और रोशान के पास है इस वक्त अगेन ब्लेसिंग, बट नाउ दिस इज लुकिंग बैड। 120 सेकंड्स के लिए फेसलेस वॉइड इज आउट ऑफ द गेम और वहीं पर मिराना एंड अनडाइंग दे आर बोथ आर डेड। बट क्या यहाँ पर कुछ और अचीव कर पाएंगे? और ये हमारी ड्रोन है अपना स्विफ्ट यूज कर रहा हो, सीधा टावर के नीचे, और उनके पास एचपी देखिए कितनी ज्यादा कम है। और ये देखिए जो बैरेक्स है, जो एंशिएंट है, उसकी एचपी कितनी ज्यादा कम है। एनवाई ने यहाँ पर कॉल कर दिया है जीजी, वेल प्लेड। आई डोंट थिंक देयर इज नो रीजन, बट ही इज सेलिब्रेटिंग. You deserve it, boy. You deserve it. Because you didn't defeat any tier 2, tier 3 team. You defeated PSG.LGD in such an important match. You know, 4 players are playing this important match from the hotel just because of the COVID isolation, and still taking them down like a man, like a pro, like a champ. Like a boss. Kudos. Giga Chad. South American region is improving day by day. Because 2015 के अंदर, you know, you saw that, you know, little beef between NA and South अमेरिका, जहाँ पर वो सेविंग प्राइवेट आरटीजी था, और आज यू नो दे टुक डाउन PSG.LGD इन अ वेरी वेरी क्लोज ऑर्गेनाइज्ड गेम. मैं इस टीम का क्रैट फैन हो चुका हूँ. दे आर वेरी इंप्रेसिव. आई थिंक आज से मैं बीस्ट कोस्ट का हर मैच देखने वाला हूँ. नॉट अफ्रेड टू फाइट एट ऑल, नॉट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स एज वेल. अगर चीजें गलत हो जाती है, दे नो हाउ टू रिकवर. PSG.LGD के ऊपर लेवल 1 से गेम के पहले मिनट से इतना प्रेशर बना के रखा. हर बार हर एक छोटी गलती, हर एक छोटा ओवर एक्सटेंशन पनिश करते हुए नजर आए. एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट अपार्ट फ्रॉम दैट वन वेरी वेरी वियर्ड क्रोनो. उसके अलावा बाकी सब कुछ तो ठीक ही देखने को मिला बीस्ट कोस्ट की तरफ से. लेकिन मुद्दे की बात तो एक ये भी है कि ये BO1 नहीं था. दिस इज अ BO3 सीरीज. अभी सिर्फ इस सीरीज का पहला गेम खत्म हुआ है. पोटेंशियली 2 और बार. एंड क्रैट, डू यू रिमेंबर जिस थ्योरी की मैं बात कर रहा था, जो आपने शूट डाउन करी थी? एस्टर ऑलरेडी लोअर ब्रैकेट में है, PSG ऑलरेडी लोअर ब्रैकेट में है. अगर PSG ये गेम हारी और फिर एस्टर से भी हार गई, तो अगर PSG.LGD ये BO3 सीरीज आती है, देन चाइनीज जो रीजन है वो ज़्यादा खतरे में आ जाएगा. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल PSG गेम हारती है, PSG विल बी आउट. एस्टर, इफ आई कंपेयर एस्टर वर्सेस PSG.LGD, आई स्टिल इन्वेस्ट ऑन PSG.LGD just because of the X factor, with nothing to say Ame and the Faith Beyond experience. So बहुत प्रॉब्लम में होगा चाइना का इस वक्त इस इंटरनेशनल का रन, क्योंकि पिछले 4-5 साल से चाइनीज टीम नहीं जीत पा रही इंटरनेशनल. तो अगर उनको इंटरनेशनल जीतना है, देन अभी यहाँ पर PSG को जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा. बिकॉज अपर ब्रैकेट के अंदर दोनों टीम जो बैठी हुई है ऊपर, दैट इज़ टुंड्रा एंड सीक्रेट, वो यूरोपियन टीम्स है, वो भी यूरोप वेस्ट. और हाइलाइट्स के अंदर इट वाज अ गुड गैंग. मॉर्टिमर केसेस की वैल्यू अलग ही चल रही थी यहाँ पर. गोजीरा को नो डाउट लाइक पीपल आर नोटिसिंग हिम. और अभी तक तो सब कुछ सही था. मैं आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी कन्विंस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद अ फार्मिंग एलिमेंट ऑफ ड्रो रेंजर. ड्रो रेंजर को बहुत बार मारा इन्होंने, बहुत ज़्यादा बार मारा है. आई थिंक पहले 10 मिनट में ही दे किल्ड हिम लाइक 4 टाइम्स. और उसके बावजूद जो गेम इतनी देर टिकी रही थी, उसका एक प्राइम रीजन यहाँ पर ड्रो रेंजर को भी मैं देना चाहूँगा. ये देखिए, आई डोंट नो व्हाट दिस गोजीरा वाज ट्राइंग टू डू. वो आगे गए एंड ही गॉट लिटरली मेल्टेड. फेसलेस वॉइड एक ऐसा प्लेयर होता है जो काफ़ी टाइम लेके गेम के अंदर लाइव आता है, बट इस वॉइड ने जो बैक टू बैक गेम के अंदर अपनी प्रेजेंस दिखाई है, हर गैंग के अंदर एक नो बेबी या मे बी अ टाइम वॉक और टाइम डायलेशन कुछ भी मारकर इस वॉइड ने बहुत दिल खुश किया मेरा. इस गेम में अगर मैं किसी से नहीं खुश हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा मुझे नथिंग टू से एंड जो हमारे फेथ बियान है उनका इम्पैक्ट पे लगा. बिकॉज जो स्लडार का धमाका हो सकता है ना, जो स्लडार का एक आतंक होता है सर्वर के अंदर, वो थोड़ा तो यहाँ पर मिसिंग था. और आमे को थोड़ा और टाइम देना चाहिए था, बिकॉज जब तक आमे को होश आए तब तक उनके पास 2 साइड ऑफ बैरक्स नहीं थे. एंड आमे तो चलिए फिर भी काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, तब जाके आपने ये चीज बोली है. नथिंग टू से का इम्पैक्ट गेम में मेरे को बहुत ज्यादा लेट फील हुआ. जब टियर 3 जा चुके हैं आपके टॉप और मिड लेन के, उसके बाद आई सॉ द पैंगोलियर एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ वर्क.
अपने उस रोलिंग थंडर के साथ। अगर वो बॉट लेन वाली फाइट आपको याद हो जो PSG जीती थी एंड देन दे वेंट मिड tier 3 लेने के लिए। So एक वो चीज़ थी जैसा आपने मेंशन किया, नथिंग टू से, मिसिंग फॉर अ बिग चंक ऑफ टाइम इस गेम के अंदर। आमे ने PSG की तरफ से अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब तक पूरी की पूरी PSG ऑनलाइन नहीं आती, अगले गेम में भी ये हालत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। there are certain players जो कि अगर वॉइड की जगह कोई और कैरी होता तो मे बी शायद फर्क पड़ता, बिकॉज यहाँ पर जो दो कैरीज हैं यहाँ पर वॉइड एंड स्टॉर्म, ये दोनों ड्रो तक पहुँच सकते हैं। यू कैन स्टॉप देम। स्टॉर्म दुनियादारी छोड़कर सीधा ड्रो पे जंप कर सकता है, वॉइड के पास शार्ड है, वो अपना टाइम वॉक मारकर ड्रो पे आ सकता है। ड्रो तो ऑल टाइम थ्रेटन है, ठीक है। अब ड्रो को बचा भी नहीं पा रहे। अभी अनडाइंग की जो डेथ थी वो ऑलमोस्ट 14 से ज़्यादा थी, 14-15 से ज़्यादा। अनडाइंग ऑलवेज गायब है। जिंक्यू मिराना खेले, मिराना क्या करती है? मिराना स्टार स्टॉर्म मारती है, सीक्रेट एरो, लीप एंड मूनलाइट शैडो। इट्स अ यूटिलिटी प्लेयर, कुछ अलग से इम्पैक्ट नहीं है। शमन लायन होता तो डिसेबल कर पाती, सर्टन डिसेबल हो पाता, और क्या ही कर सकते हैं उसके बाद। और जितना इम्पैक्ट स्माइल का था, स्माइल का चलो ठीक है, स्टॉर्म स्पिरिट खेल रहे थे, उनकी ज़्यादा किल्स भी नहीं है, ठीक है, बट एवरी टाइम जब भी उन्होंने इनिशिएशन किया है वॉटेक्स के साथ भी, मैनेज टू गेट सम किल। सो एक शुरुआत हो जाती है। मैन एडवांटेज भी अगर कोई लाके दे रहा है तो मैं तो बोलूंगा कि गले लग भाई, बहुत बढ़िया काम किया आपने। एग्जैक्टली, आगे की टीम फाइट आपके लिए आसान बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये आज के दिन का शुरुआती गेम का भी पहला ही गेम था। BO3 सीरीज हमारी चल रही है और आज के दिन जैसा क्रैट ने भी बताया था, आज सिर्फ एलिमिनेशंस होने वाली है। आज दिल टूटेंगे, दिल टूटेंगे। एक सेट अभी मतलब अगले 1 घंटे के अंदर कंफर्म हो जाएगा कि दिल टूटेगा। मेरा टूट सकता है, मेरा हाई चांसेस है, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू सी नथिंग टू से लीव, बट लेट्स सी, जो होना है वो होगा ही। मे द बेस्ट टीम विन। मैं जो कह रहा था वो बात मैंने उल्टी बोल दी वैसे। यस सर। PSG अगर ये हारी तो PSG बाहर, बीच कोस्ट आगे जाएगी। अगर उन्होंने एस्टर को भी हराया, एस्टर भी बाहर। चाइनीज टीम्स आर आउट। डू यू बिलीव दैट कैन हैपन? But ठीक है, I think Sir Action Slacks is up for something cool, so let's have a look. Such a hype audience today and such hype players as well. You know, despite you and I accidentally dressing like Christmas today, I wanted to give you a gift. Oh, thank you. You know, you're really good at interviewing players and you haven't had a chance to do that at this TI. Would you like to be the ones to interview the players? Oh my gosh, I guess we could do something after game 1. That would be a really fun opportunity. Why Okay. don't you interview Beast Coast? All right, I'll interview Beast Coast. I'm a little nervous. Okay. Thank you so much for taking time. What were your thoughts about that game 1? Are you ready for game 2? Oye, Jacobo, ¿qué haces hablándome aquí? Estoy a punto de jugar una partida, me estás tratando de esta manera. ¿Te crees que puedes ganar el peo en Okay, espacio ahora? I'm so sorry. I didn't mean to interrupt you. Please forgive me. I just want to wish you good luck. Enséñame tu tabuf, déjame jugar, por Dios. All right, thank you very much. Okay, well, I think Beast Coast is ready to go. I apologize. We'll leave the interviews for Casey. Okay, well, back to you. I'm so sorry. Back to you. Well, it was a good attempt. It was a good attempt. They might look like cute puppies, but they were like ferocious beasts. And they played like that as well. This was a fantastic opening games, and I know that there were a lot of people worried, like, oh my gosh, they're ill. They're gonna, they performed so well against EG, knocking them out in the main stage, and then now they're sick, and it might have to end their run. But they look good. They came out swinging, and I think though that this first game, Jenkins, will have a big impact on the type of game we're gonna see coming out from the most versatile team here, PSG.LGD. Because when you say, oh, we're just gonna fight a lot, which Beast Coast kind of wanted to do, PSG.LGD can do that too. Yeah, they can, and they're also a team that, of course, we saw from True Sight, fairly capable of coming back from a fairly devastating first game or first couple of games. So this is nothing abnormal for them. I'm totally confident we're going to see a very competitive game 2. Hopefully. We'll get a game 3 out of this, but yeah, like we were talking about, both teams are like this, so even if the second game goes the way of LGD, I'll say the exact same thing for Beast Coast on the flip side. Yeah, I mean, you got it. Both teams have been playing great, and we know that this is not PSG.LGD. We know that they can also force out that third game for Beast Coast, and at this point, Lacoste, who knows where the series is going to go, because both of these teams, we know how they play at their best. Yeah, absolutely. I mean, we did mention a couple of times that PSG.LGD, they do have the most versatile hero pool. You know which team is the second best? It's Beast Coast. So it's very difficult to prepare for both of these teams because they play variety of the heroes. Like, I'd say for years, even for me, when I saw Beast Coast draft, the first thing that comes to my mind is Weird.
Like, oh, it's weird. It's weird because you don't understand it. And it takes you time to understand how capable this team is in terms of like spreading their wings across every single hero. Like they have their own meta. Like one of the reasons why South America is so popular, because they don't care what others are playing. They form their own meta. They come with their own ideas, and a lot of their ideas are gonna get copied. Yeah, I mean, I like that point a lot because I remember watching Beast Coast maybe a year and a half ago, and they were playing things like mid Broodmother when every other team was playing her offlane and refused to put her in the mid lane. They were playing Spirit when the hero wasn't popular. Obviously, Chris Luck was one of the mid Snaps, the mid Marses that we see time and time again. So I just really do enjoy regions that have so much faith in their abilities that they are not swayed by other regions. But I do think LGD have that same quality themselves. That game, honestly, could have gone either way at any point. It was so back and forth. It was so competitive. So I have high hopes that LGD are going to mentally recuperate and go into the next game and do well. Yeah. So let's focus a little bit on what we like to see change. We already heard Gunner's thoughts on it, that it's just about the opening, and the rest, obviously, the rest of the draft will change a lot depending on that opening. And he just mentioned two heroes. The first pick of LGD was Undying. He didn't like it. And the first pick of Beast Coast was Visage, which he really, really, really liked, which probably shouldn't be given away again. I'm down for some Snapfire. Like, this hero did ruin Undying. They did have Raid Pact as well on Mirana, and he did go for level 15 talent, extra 2 Little Shredder attack, so you can easily kill the Tombstone, and that was his pretty much main goal. And I like the itemization, starting with maxing out that Little Shredder, also going for the Solar Crest to amplify the damage of his own team, because they did had a lot of minus armor, and then proceeding to get the Force Staff. He had the Ogre Seal Totem and the Blink Dagger, so he could close the gap so quickly and push someone out of the trouble. I think LGD might just end up going for their Chen in the next game. I think that they weren't prepared for Beast Coast to play this Visage because, like I said, it's not really a strategy they've run or a hero they've really played throughout the group stage. So that definitely caught them off guard because I almost 99% believe that they were trying to pair that Undying with the Visage themselves. So next time around, we're going to see entirely different openers. You live and learn. It's learning in rapid fashion. Only 10 minutes in between games means adaptation has to come swiftly. There is, of course, one big up for PSG.LGD that during the game it has already been Zhao8 that's already decided what he wants to change. He's doing all the drafting, Jenkins. That will be a big weight off the shoulders from PSG.LGD, surely. So he wasn't drafting game one? He was. Oh. But it's a big up that he can look at the game and already think about what he wants to change. Okay, I see what you're saying. I was like, wait, who's drafting for LGD? No, for sure. Like the whole time he's watching from the perspective of, you know, he's not microing. He's not playing the individual hero, and he can just look at, oh, we really had to take the mid tower early with this lineup, and we couldn't do it because they had these picks that come out later. Like it's much easier when you're like out of the player perspective to isolate like strategically what went wrong, because you know, you're playing Mirana, you're trying to hit these arrows, you're focusing on all this micro stuff. So yeah, I'm sure he's got quite a few reasons for why he thinks that game was harder than it should have been. But I'm actually really glad that you brought that up, Shiver, because I think that a lot of people had a misconception regarding how Zhao8 tends to coach PSG.LGD, and when last year's True Sight was released, I feel like a lot of those misconceptions were cleared up because people assumed that he was this very strict, doesn't take input from his team or pushes his ideas on others, but it was actually quite the opposite. He was taking input. Some of the picks that people were blaming him for actually came from his team, and he just trusted them, listened to them, and was able to acknowledge his own mistakes. He took blame as well, yeah. So which is important. His style of coaching, I think, is probably what PSG.LGD need right now to bounce back after a loss like that. And we saw Beast Coast players on the phone calling their parents, "Mom, I'm about to, win against LGD 2-0. I gotta go. Bye." What'd you say? I should pick Dad? I'll pick the Pudge. All right. I don't think we're gonna see Pudge pick. I know you guys really want Game 2 is Pudge and Sniper territory. I will say that Hector has played it in this tournament. LGD, of course, they invented the Pudge Sniper, of course, copying Arkosh Gaming from North American Division 2, Division 3. Yeah. And Sniper is such a good hero. I mean, we were talking about it in the green room. Yesterday, we saw
exactly what this hero could do in the hands of Hero yesterday in Entity Series versus Liquid. It looked so good. We're wondering why other teams aren't picking this hero as their Hail Mary. I mean, honestly, it feels like he plays the role of Grau and SF better than they do themselves. It felt very funny seeing the grenade used to get closer to a person. Yeah, that was a first. That was a TI. I don't even need to look at the stats. That's a TI history first. TI history first. I mean, very unusual. How many times has Sniper been played in TI with that ability? Just this TI. Yeah, I don't think it was that last year, right? No, it was not. Concussive grenade? I believe not. And even if it was, I don't believe Sniper was picked very regularly last year regardless. Unfortunate. Yeah, unfortunate indeed. We see the players already getting ready to get into that draft of that second game of this series. A lot of pressure for both of the teams. Of course, a game away from securing top 6 for Beast Coast. They've never gotten that far, and it would mean a lot to them, obviously, to go the entire route, especially with the circumstances they're playing in right now. They want to prove that that is not stopping their road, and so far, 1 game down, they're looking good. For PSG.LGD, though, this is a rough position to be in because they've been on the brink of elimination before. They're no stranger to that, but normally it's only once they reach top 3 or even top 2 that they are faced with this amount of pressure, right? Yeah, I'm not too worried about PSG.LGD because they are the team that can mentally reset like almost immediately. Like, they don't need any extra time. They know potentially. I feel like they already have a plan. Okay, if we lose, it's whatever. We keep on going. They're like soldiers, you know. They just have what it takes to have this W here as well. They do. Actually, to that point, I do feel like maybe that is the case now in this TI in particular, but in the past it felt like one of their biggest weaknesses as a team was that they were winning so often that when they did lose, they had no idea what to do after those losses, and you could see them unravel, right? It happens especially when they just have group stage dominance. We saw it in Arlington, we saw it last year in TI. It feels like the one thing that they were lacking was the ability to bounce back from really bad losses. So this could be the setting and the stage that gives them that ability, but it could also be the setting that they could just completely get squashed in, who knows? One thing to notice is teams that are coming out from Group A and from Group B, because I think a lot of people did assume that Group A had stronger teams. Like you had this PSG.LGD, you had EG, even RNG, Boom Esports, OG, but they kind of formed their own meta in Group A, and I think this is one of the reasons why the other teams from Group B are doing much better, because they played against what seems to be the better teams at this international. So that could have some impact. I got a theory on that. And this actually goes back to what Effie was saying about LGD. So Group A has 3 ties on average. Group B had 4.2 ties on average. And so I think there's been a huge storyline this TI of teams going through the fire and the flames, sometimes flaming coming from Reddit, of course, and then coming out stronger. And to what Effie was saying, LGD, they are used to being the Goliaths. They're used to being the guys that are supposed to win. And I honestly think it'll do wonders for their mental state to just be the guys people are like, oh, what's going on with them? They could lose, to feel that for once. Like Puppy was saying in the interview, if you win 10 games in a row, if you lose 10 games in a row, you got a problem. If you win 10 games in a row in scrims, you got a problem. You want to go through the fire and flames so you can learn. And actually, if PSG.LGD are able to bounce back after that game 1 and take this series, I would credit that to their loss versus Team Spirit, because when they lost versus Spirit in Arlington, that was probably one of the most noticeable kind of unravelings or tilts that we as a spectator were able to see, because they went from so completely convincing in their victories in game 1 to just slowly with every game degrading a little bit until in that last game, in that game 4 where Spirit beat them, they didn't feel like themselves at all. So maybe from that series they took these lessons and they applied these lessons, and we might be able to see it here today. I hope we do. I hope we get a 3-game series. I hope so too. And now that we have a little bit more time, I want to talk about the man on our screen right now and compare him to the man on our screen right now as well. Okay, so I wanted to talk about
about the mid laners because nothing to say. We saw him on the Pango previous game, and we saw C-Smile, Chris Luck on the Storm Spirit. Two very different heroes. We saw Chris Luck go in hard time and time again. It was a little bit harder to do for Nothing to Say, but I want to talk about the different styles of mid lane they play, Jenkins. How do you analyze their style of play, would you say? I mean, it depends on the game. I feel like Nothing to Say is more of a like farming style mid laner, whereas Chris Luck he just gets in your face. He's very active. Very active indeed. We're going to find out what they're going to play up against each other because it's drafting time. Game 2. PSG.LGD versus Beast Coast. Game 2. Turn to ban. Game 2, take a deep breath, everyone. This is a big one. Elimination on the line for a lot of people. The tournament favorites in PSG.LGD. Now, of course, after the tournament has begun, we have slightly adjusted our perception of who is the top dog, and it still is very strange to see potentially PSG.LGD being left behind on top 8 this TI. Beast Coast, however, they are looking hot, they are looking ready, and they are looking quite unstoppable, especially with the fighting style they had in that first game. We got a little bit of an adaptation, of course, in the draft as expected. First pick going away to Beast Coast means Beast Coast removes the Visage. We got Undying removed as well, and that meant that Tiny is left in the pool as well as Marcy. Interesting to note, in both of those first pick together with the hero we talked about during the first game, a very popular one for both teams, this time for PSG.LGD. Leshrac? Leshrac is an insane hero right now, just abusing the power of the Bloodstone for himself. It's his own item, and yeah, we need to see if there's going to be an immediate response here from the Beast Coast. Because they know that this Leshrac, let me just double check, because I don't remember 83% win rate. Okay, and Fade Beyond was not playing it, and this is a good response. This is, you know, one of the classic ones where Nyx Assassin is very easy setup to counter Leshrac, burn his mana, make his life really miserable pre-BKB. But we saw in Secrets series yesterday that they did pick Leshrac into Nyx Assassin confidently, and it worked out in such a spectacular way. It was offlane Leshrac, and they also needed a counter to Slark, so it's a bit different. But yeah, it still takes a lot of confidence. But Venomancer, Ben, that's an interesting one. Very early on as well. But about the Leshrac versus Nyx thing, so Nyx is definitely a nuisance and a way to catch him, but Leshrac has become the kind of hero where you pick him to try to snowball a lane advantage or just push a few towers, and if he can do that for your team, then he's probably ticked off like 3 of the boxes that you want him to do already. Yeah, he's the hero. Yeah, and then in terms of counter picks specific to this hero right now, you can just itemize it for it, which is the beauty of the hero, because I feel what he offers a team right now in terms of team fighting, in terms of DPS output, in terms of objective taking, far outweigh the ability of getting counterpicked. And I think that picking him in the first phase is probably what most teams from this point onwards in TI are going to look to do. I agree, and going back to Lacoste's point as well, it's all in the Bloodstone. Like, this item is so powerful, not only from mid, but it's a really nice build-up for an offlaner as well. The small items that build into it all feel really good to get individually and make you tanky up. So you can, it's not like you have to like hard farm your Bloodstone, ignore your team. You can go fight and still get your Bloodstone at a good timing. Yeah, and the timing for it is so early too. Like the average timing is around minute 15, and we see all these really impactful items come out around minute 15. The average Wraith Pack timing, I believe, on heroes like Broodmother are minute 15. For this Bloodstone is minute 15. And speaking of timings, I like this ban on Io. You know, hero that we haven't seen played much. I think only one game. Yeah, one game only. And this is the hero that can mess up with the timings, because Io Leshrac has been super popular, especially as Dire, because it gives you infinite mana. It does allow you to have a partner to run at the lanes and just disrupt. So you can potentially like get more farm, get more levels, and also like take a fight 2 minutes before when enemy carry or a mid laner does not have a BKB, which can make a lot of difference. Yeah, for sure. And they have run it before on LGD during the group stages. So Beast Coast were definitely prepared for that and just eliminated it. Disruptor is another hero we've
seen become more and more valuable as the group stage and main stage has progressed. Now, why is that? I think the little bit of damage that comes on Glimpse is actually fairly impactful. It makes it like already good to play. Yeah, already you wanted to max that ability, but it still kind of felt bad because you wanted the Q, so you're not like useless. It felt like it was a non-damage dealing support when it comes to the fight. But also, the ult is insane now. It's huge, and the extra second, like, you really feel it. We've seen people get tossed out of the disruptor kinetic field and then still die, even though with the mistake they still die because it's just so huge that the person can't run out of it in time before it despawns. But not only that, the issue with Disruptor was he did get a couple of nerfs in the last year. I played this hero a lot, so it's very sad because there goes my Mamari, you know. But you used to just have to get only 2 points in his Q in order to be able to do damage and have impact in the lane. But the Q got nerfed significantly, and now if you actually want to play in that same style, you have to put 3 points in it. But if you're playing Disruptor, you want to max your glimpse. You don't want to put 3 points in a spell that is barely going to give your team that much impact early on. And it's actually really cool because you can get so many of these kills on lane simply by maxing glimpse. If the offlaner runs away from the creep wave, you just bring him back, you do an extra, 150 damage, and then your carry can kill him. And that plus 150 damage in the early game, in the laning stage, makes a huge difference. It is. And looking at this Crystal Maiden focusing, so that means that Tiny is going to be, I mean, Tiny can be still played as an offlane for Beast Coast because they do love to flex a lot of the heroes. But looking at the carry, I wouldn't be surprised if we get some old school Jug plus CM action, or maybe even a Bloodseeker. I wouldn't mind seeing Bloodseeker because like just having a strong lane could mess up with PSG.LGD's timings. Like, strong lanes, Nyx Assassin definitely not a strong laner, but if paired up with some other offlaner, yeah, okay, it's going to be Mars for now. Mars for now, indeed, and an instant lifestealer. That was a telegraphed lifestealer with the Venom and the Batman. I would imagine that is not a surprise coming for Beast Coast. I like this lifestealer a lot, actually. It's good against every single one of Beast Coast heroes so far, and it pairs up well with Disruptor in the safe lane. Usually you can go Corrosion on lifestealer. You don't want to unless you know you can get these kills, but you can just pick up something like that, and then with the glimpse that we were talking about, can set up for a lot of kills on either the Nyx or the Mars early on. But also lifestealer is a carry who does lack a little bit of damage up until he gets his Armlet and his Deso or whatever build that they tend to go for. But you're also playing with a Marcy, right? You get the free damage from Sidekick, which allows you to hit the lifestealer timings 2 or 3 minutes earlier, which is incredibly valuable, as Lacoste mentioned how important it is to disrupt or be able to play on these timings. And you need to have a hero that Lifestealer is afraid of, something that goes through magic immunity, because like these heroes, he's really not threatened. There is a save from RC, there is a glimpse, like there's potentially a lot of ways to protect the Lifestealer, not necessarily a real save, but these spells do a lot for Lifestealer. So I'm still thinking about the Juggernaut. Maybe, I know that K1's not a big fan of Ursa, but it could work. Slark's an Ursa alternative that does kind of a similar thing. It's less good against the Disruptor, but yes, Slark into Disruptor Lashrak might be a bit difficult. Bloodseeker still feels pretty good. Yes, BKB, for sure. BKB piercing for the Lifestealer as well. It's just, it does feel like a lot of melees so far. Guys, it would be so cool if PSG.LGD picked Spirit Breaker here, because we've seen the Spirit Breaker and Lifestealer combo pop off so much, but I know that Xiao8 is a huge fan of the hero. He is. He's not playing mid though. It's nothing to say. It doesn't matter. It's his personal favorite hero, so I'm sure he's maybe potentially discussed it, because we've seen it be impactful in Liquid Series, we've seen it be impactful with Tundra, and we've seen how good these two heroes are in unison together right now. And also, the charge plus the glimpse gives you a lot of vision, so let's do it. Bring out the cow. Come on. Where would you put him, though? Faith Beyond, I think, would probably have to play it. He's not played it yet, but also he's played like basically every hero, every offlaner in Dota, so... Ursa is going to be the last ban coming out for PSG.LGD. As mentioned, that would have been a good one against Lifestealer. So we'll see which one Beast Coast goes for, if that will indeed be the Slark. Anybody having some potential, very small chance to smell mid-Slark? That was a long time ago, though, so I doubt that's going to happen. But then we'd have to see like a carry Tiny. I think, is Drow banned? I feel Drow is not banned. I feel like Drow can still be good for them. Kite the Lifestealer, silence the Lifestealer. Lesh also is a hero that like runs into you. Drow can just kite Lesh and stay out of the range of the ult. I think I still feeling Juggernaut because it's a safe pick. I know that K1 doesn't like Morphling a lot,
that could have been an option. Not so good against the Disruptor, but having a free BKB when you turn into Lifestealer. I think the other one is Terrorblade. The carry-to-carry matchup is good. Good against the Leshrac as well. Oh, we forgot about this hero. I actually forgot this hero was not banned. The thing about the Void in this game is it's not as terrifying as the last one because it doesn't have the Snapfire to play with. Yes, we saw it does have how Tiny though. Yeah, but Tiny needs a little bit of time to get that tree volley, right? But we saw how impactful Hector was able to be early on, especially when LGD took that first rush because he had the damage to follow up on his Chrono early. This time around, it's going to take a little bit more time to bust out that really big damage for the Chrono. So he's got to farm. So it's going to be a more farm-intensive kind of game from Beast Coast, which kind of allows LGD to snowball off their Lifestealer timing if they do get the last pick here. And if you notice, they ban out the Ursa and the 12 Warlord, so they're probably just protecting whatever melee offlaner comes out of them. Also, Faceless Void into Disruptor can be a difficult matchup sometimes. You know, pre-BKB, you time walk. If they have vision, glimpse back, and then you're going to be food for heroes like Leshrac. And if you are charged at the same time, there will be vision continued. Is Slardar banned? It's not banned, right? Slardar is Isn't not it just banned. Slardar again? You get the Slardar Lifestealer combo, hero to run in, stun people for Lesh. The minus armor coming out. Yeah, minus armor, yeah. Marcy Slardar sounds pretty good against, it beats Void in lane, or, you know, does well against Void in lane. It's just, it didn't feel that great in the previous game, so maybe they're feeling against it for that reason. You know what? I'm down for some bench off lane. Oh, okay. New hero joins the fray. All right. Okay, so I think that the logic behind this axe is that they want the BKB piercing disable to just be able to play all the time, right? They don't want to have to worry about any kind of timing, especially coming out of the Void. And if you have this axe Berserker's Call to play against, it should be relatively simple. Yeah, the hero isn't what it used to be, but I think for something like that, it can accomplish a lot. Also, guys, don't forget that this team lost to Collapse's axe in Arlington when that hero wasn't in Meta 2. And it was also a game that was for a lot of stakes, right? It was the finals. So maybe they just took a little bit of a lesson from Spirit there and are gonna carry it on to this game. Yeah, I think that's cool. Definitely. In the first game, I didn't lean any way, but I'm going to give a slight advantage to PSG.LGD this time around, because this lineup doesn't have any cooldowns. Like, they are going to be able to punish the Chronosphere, especially if it's not placed well, potentially threaten the Roshan. I like what they got. And in the Fast Bomb, followed up by Leshrac, by a Disruptor, it's a very strong lineup. It's also very early. वेलकम बैक वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन दी इंटरनेशनल डोटा 2 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हम लोग एलिमिनेशन स्टेजेस पर आ चुके थे सुपर जॉनी जॉइन बाय क्रैट राइट देयर आज के दिन का सबसे पहला लोअर ब्रैकेट का मैचअप चल रहा है व्हिच इज PSG.LGD वर्सेस बीस्ट कोस्ट अगर आप लोग अभी ट्यून इन कर रहे हैं तो हम लोग बढ़ेंगे अब गेम नंबर 2 की तरफ पहला जो गेम था वो बीस्ट कोस्ट ने डोमिनेटिंग विन के साथ अपने नाम किया लेकिन अब गेम नंबर 2 could mean a time for redemption for PSG.LGD or maybe it's the time for their elimination. It's a fourth day. हमने बहुत सारे BO3, BO1 चार्ज कर लिए और हमें पहली बार Axe देखने को मिला है. Yes. I'm more than excited और अच्छा लगेगा देखने में because Axe last time हमें भी पता है we all have a special memory जब OD Pixel literally shouted, you know, called a name for like 10 seconds. Seb! और Val made money out of it. अगर आप 100 रुपये डालोगे तो वो सेब बोलेगा, आप 200 डालोगे तो वो सेब बोलेगा, अगर आप ज़्यादा डालोगे 30,000 10,000 तो सेब बोलेगा. So हम वही देखने वाले हैं. जितना पैसा मिलेगा उतनी देर चिल्लाएंगे. सेब की जगह फेथ बयान जो अभी आज Axe खेलने वाले हैं. ड्राफ्ट इज नाइस cause Lifestealer is a dependable hero. अच्छा है. मिड पे भी लेशरैक दिखेंगे आपको नथिंग टू से और वहीं पर इवन बीस्ट कोस्ट का भी ड्राफ्ट आप कम नहीं हाक सकते. दे स्टिल वेंट फॉर सम बेसिक हीरोज. बट क्रैड अभी फिलहाल एक इंसान को देखते हैं दैट इज सर एक्शन स्लैक्स who's on stage. 虽然惜败了，然后上一把你们是输给了虚空，然后这把你认为你的 BP 他们又选了虚空，你认为你的 BP 有没有做出适当的调整？以及包括这次你们选了马西，是否有点是在依赖马西把这个队友给甩出来？ 哦，没有啊，因为他们虚空就没有别的输出点，虚空照大只能靠自己输出，感觉他们虚空选的不太好。This game we feel that the Faceless Void doesn't have any additional supports or additional firepower from the team that can assist him in his chrono. So this game we felt that the Faceless Void pick wasn't that good from their team. Okay, fantastic. And real quick, why Axe? We haven't seen much of this hero.
最后一个问题就是为什么选斧王呢？这个英雄我们目前基本上没见到过。因为斧王是 Face 边的绝活，然后他夺冠英雄。X is Faith Bian's his best hero, so we're counting on him to win. All right, fantastic. Well, we are counting on them to win as well for potentially a Game 3. All excited here in the arena. Let's get ready and send it over to our casters. Oh yes, I just got to know that Faith Bian is very confident with Axe, and in Zawit, Zawit said that they are counting on him to get this game and get this best of 3 to the 3rd game. So everything sorted. Tap in mid पे nothing to say versus Smile. Smile is playing Tiny. Tiny versus Dashrak के अंदर it's very dicey to say कि कौन ज़्यादा better है. Cause दोनों के पास अपनी अपनी abilities हैं. न्यू करने के लिए Tiny भी काफ़ी लाजवाब प्लेयर है, जैसे कि आप Avalanche टॉस कर ले. तीनों अगर लेन देखते हैं, Axe and Disruptor already started to haunt this QT Void. अब ये Void ने जिस तरीके से लास्ट गेम खेला था, no doubt this guy deserves a lot of things. बट इस गेम के अंदर चीज़ आसान नहीं होने वाली है, बिकॉज पहले उनके सामने एक ऐसा प्लेयर था जो कि आप मान लीजिए इतना इम्पैक्ट नहीं कर सकता. बट अगर आज के टाइम पे इस एक्स को अगर आपने अंडर एस्टिमेट किया, देन दिस एक्स कैन बी योर बिगेस्ट नाइटमेयर. और पहली लेन क्रीप हटने से पहले यहाँ पर टाइनी की एचपी देखिए ऑलरेडी 20-30% पे आ चुके हैं. एंड वहीं पर इफ़ यू टॉक अबाउट लशरैक, लशरैक इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट. लशरैक के पास आई बिलीव अभी भी कोई माना रीजन आइटम्स होगा. और अगर आप टाइनी की बात करोगे, टाइनी के पास अभी तक बॉटल के पैसे नहीं आए, बट उनके पास कोई मेडिक भी नहीं है, ना कोई टैंगो है, ना कोई हील है. और अब क्रिस्टल मेडन पे भी यहाँ पर थंडर स्ट्राइक लगा दिया, जिससे कि शी विल बी टेकिंग सम डैमेज ओवर द टाइम. वेल लेकिन चलिए देखते हैं PSG.LGD इस बार क्या कमाल दिखा पाती है. गोजेरा को देखे काफी प्रेशर पे डाल चुके हैं जिनक्यू, एंड ही हैज टू फॉल बैक जस्ट अ लिटिल बिट. इस मार्सी से आपको बच के रहना पड़ेगा, वरना जो बॉडी स्लैम आपके लगता है बहुत ही जोर की लगता है, एंड उसके बाद और भी फटके उनके टीममेट्स आके आपको मार सकते हैं. सो यू हैव टू वरी अबाउट दैट एज वेल. बट फिलहाल आई मीन काफ़ी इवन ट्रेडिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट इन एवरी सिंगल लेन. सी स्माइल अनलाइक द प्रीवियस गेम इस बार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और ये लेशरैक लेट गेम में तो और भी तंग करेगा. ओह द टाइनी माइट गो डाउन. नहीं, यू नो कोशिश अच्छी थी यहाँ पर, बट अगर ऐसे ही चलता रहा तो वन थिंग फॉर श्योर, बिकॉज जो नथिंग टू से है वो डिनाई पूरे करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ क्रीपिंग तो उनका लाजवाब है ही. उन्होंने रून भी कलेक्ट करा विदाउट लूजिंग अ सिंगल क्रीप. जो क्रीप की एचपी कम थी, अगर उनको डिनाई का डर होता, मतलब डिनाई का डर था, इसलिए वो अपने साथ ही ले गए. और जो उनका मेन क्रीप है उन्होंने वो मिस भी नहीं किया, और ये लगाया यहाँ पे स्टन. एंड लशरैक इज मूविंग टुवर्ड्स दैट रून, बट दैट टॉस सॉर्टेड समथिंग फॉर टाइनी. अब टाइनी सीधा वाटर रून कलेक्ट करेंगे और अपनी लेन के अंदर वापस आएंगे. विस्पर इज फैंटाबुलस ऑन दिस हीरो. अगर उनका गेम भी सही चला, अगर उन्होंने कुछ स्पीयर्स कनेक्ट कर दिए, अरीनाज बढ़िया निकाल दिए, देन एक अच्छी एडवांटेज तो होगी. बिकॉज अगर अभी देखें देन अरीना के अंदर क्या चीज़ है जो उनको एक अच्छा फॉलोअप दे सकती है. लेट गेम के अंदर एक ट्री वॉली, क्रोनो के अंदर ट्री वॉली एक अच्छा फॉलोअप हो सकता है. रेस्ट आई कांट सी एनीथिंग. मे बी क्रिस्टल मेडन की अल्टीमेट, बट वो कुछ ज़्यादा ही वॉम्बो कॉम्बो की उम्मीद है. और जितनी बार मैंने वॉम्बो कॉम्बो की उम्मीद करी है इस गेम के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर, मुझे हमेशा एक ही चीज़ मिली है, निराशा. आप और फिक्सेस साथ में जब बोलते हैं वॉम्बो कॉम्बो, तब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जिस टीम से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो टीम गेम बहुत पूरी तरह हारती है. सबसे ज़्यादा निराशा आज तक किसको मिली है? जो हर आंसर के अंदर बोलते हैं कि क्या चल रहा है, एंग्जाइटी. ओह मिस्टर शर्मा जी के जो ह्यूमर जोक्स होते हैं क्रेजी होते हैं, वो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि ये इंसान ने बोला क्या. वंस समवन आस्क्ड हिम वेयर आर यू गोइंग, कहते डिप्रेशन में. मजेदार बात ये थी कि उनको रास्ता बताना था गाड़ी का कि हम जा कर रहे हैं, और वो आगे बैठे थे. शर्मा जी इज फन. मींस लाइक मैं दीवार में गाड़ी मार दूं. कभी कभी ये जो एक हदें होती है ना, ये आपको पता होनी चाहिए आपको क्या करना है. बट ये मेरे ख्याल से अब अगली बार जो क्रिस्टल मेडन दिखेंगी एक्स को, एक्स विल बी लाइक ही विल बी गोइंग फॉर दैट बैटल हंगर. बट उससे पहले उन्होंने काफ़ी अच्छा जूक किया एंड ही वेंट बैक टू द सेफ्टी. बट यहाँ पे जो LGD के वाई हैं उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि नथिंग टू से गॉड लिल इनटू द टावर, और वहाँ पर नेक्स्ट असैसिन का एक अच्छा सपोर्ट आया, उन्होंने स्टन लगाया, एंड दे गॉट टू यू नो क्लोज दैट किल ओवर दैट लशरैक. लशरैक इस वक्त इस मेटा के अंदर काफ़ी ज़्यादा पिक हुआ जा रहा है. पहले लोग लाइटनिंग स्टॉर्म पे गेम खेलना पसंद करते थे, बट अब लोग स्प्लिट अर्थ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं. तो कूल डाउन काफ़ी कम हो चुका है, जो इम्पैक्ट है, जो डिले है, उस बहुत सारी चीज़ों में वो काम हो रखा है.
Let's see Smile back off करते हुए right in the nick of time. He has his teammate Gojira बिल्कुल उनके पीछे खड़े थे, but top lane में अब थोड़ी सी मुठभेड़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है फेथ बयान और K1 के बीच में। थोड़े से HP ट्रेड ऑफ होते हुए दोनों ने एक फटके मारा एक दूसरे को and then they walk back to their well एक प्लेयर न्यूट्रल खाने चले गए, दूसरे अपने टावर पे वापस आ गए। अब एक्स के पास है रिंग ऑफ हेल्थ, इसका मतलब उन्होंने 875 रुपये ढाल दिया, 875 गोल्ड ढाल दिया जो हील के लिए। अब अगला आइटम उनको चाहिए वाइटैलिटी बूस्टर। उसका मतलब है उसके बाद ये जो हीरो है, दिस हीरो विल बिकम अनकिलेबल। ये प्लेयर लिटरली आंसू निकाल देगा लोगों के, बट दैट फ्रॉस्ट ओके देन एक और बार यहाँ पे हो चुका है। स्माइल को यहाँ पे बॉडी स्लैम मार के गेम से बाहर निकाल दिया। एंड कुछ देर पहले लेशराय को भी इसी जगह पे ध्वस्त किया था, बट अब हमको वहाँ पर एक नई लाश दिखी है जो कि बीस्ट कोस्ट के मिड की है। किल की बात करें, दोनों टीम के पास 2-2 किल हो चुकी हैं, 5 मिनट गेम के अंदर खत्म हो चुके हैं। एंड जो नेटवर्क का हेर बदल है वो अभी किसी टीम को ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। थोड़ा सा मतलब मैं कह सकता हूँ कुछ खुले इस वक्त PSG के पास ज़्यादा है। वेल थोड़ा सा तो गोल्ड का एडवांटेज PSG के पास जैसा आपने बोला है, बट इस एडवांटेज को मेंटेन करके चलना होगा। वहीं पे अगर बीस्ट कोस्ट की बात करें, दे हैव टू मेक श्योर कि ये एडवांटेज ज़्यादा देर तक ना टिके, बल्कि उनके जो कैरीज हैं, उनके जो कोड्स हैं, उनके पास जल्दी से जल्दी फार्म आ जाए, स्पेशली ऑन दैट टाइनी, क्योंकि वो टाइनी की वैल्यू मिड गेम से पहले निकालना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर फाइट्स अच्छे से एंगेज नहीं हो पाती। एंड इफ दैट टाइनी इज टेकन आउट वेरी क्विकली, अगला टारगेट आती है सीधा बैकलाइन। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बट ये देखिए स्लो कर दिया है काफ़ी ज़्यादा। एंड येस क्रिस्टल मेडन के कुछ स्पेल्स है इस वक्त इम्पैक्ट के अंदर, जो फर्स्ट किल का बफ है वो कुछ ज़्यादा कर दिया है, जो स्लो है वो बहुत ज़्यादा है। एंड उन्होंने फ़ायदा उठाया, और ये पहली बार नहीं है कि यहाँ पे डिसरप्टर को काफ़ी ऑफ गार्ड पकड़कर पनिश किया है। वो एरिया का विजन पाना हमेशा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और इस वक्त उम्मीद वही है कि कैसे आगे बढ़ते हैं। बट ये देखिए एक्स का वैनगार्ड कंप्लीट हो चुका है और एक्स ने ब्राउन बूट्स भी मंगा लिए। अगला आइटम जो हमें इस एक्स पे दिखेगा वो है एक बिलिंग डैगर, और उन्होंने कितनी प्यारी कॉल लगाई है। कॉल थोड़ी देर और चलती तो शायद से ये जो टाइम वॉक है वो इतना आउटपुट नहीं दिखा पाता, पर जितना भी डैमेज उन्होंने दिया था काउंटर हेलिक्स से वो सब कुछ वेस्ट होता। बिकॉज या टाइम वॉक जब आप मारते हैं देन कुछ सेकंड पहले जितनी आपकी HP होती है, वॉइड की HP उतनी ही हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आइस फ्रॉग एंड साइबरमैड ने इस गेम के अंदर बिल्कुल रचनाएं करी हैं, और हर प्लेयर के जो बैलेंसेस हैं बहुत प्यारे हैं। बैलेंसेस तो प्यारे हैं, बट मेरे दिमाग में भी एक ही सवाल चल रहा है कि ये जो फेसलेस वॉइड है क्या इस गेम में भी वही परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाएगा जो हमने पिछले गेम के अंदर देखी थी। पिछले मैच में K1 का परफॉर्मेंस वाज एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। आई मीन फ्लॉलेस, एक फ्लॉ था दैट वन मिड क्रोनो जिसमें इन्होंने अपने टीममेट्स को धर दबोचा था, बट नहीं होना चाहिए। ऑल्दो दे गॉट अ किल, बट कलिंग ब्लेड से नहीं आया। कलिंग ब्लेड से आता तो एक्स को आर्मर मिलता एक्स्ट्रा, तो फायदा होता। बट एंड ऑफ द डे इफ यू मैनेज टू गेट अ किल, इट्स अ किल, एंजॉय दैट किल, सेलिब्रेट दैट किल एंड जस्ट मूव ऑन। अगर कलिंग ब्लेड से आता तो और ज़्यादा मज़ेदार रहता। एक्स को ज़रूरत है, बट कलिंग ब्लेड की फ़ायदा है कि बहुत छोटा कूलडाउन अल्टीमेट है ये, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अभी तो बस शुरुआत है, ऐसे ही चलता रहा देन और सारी चीज़ें वो कर पाएंगे। बट ये यहाँ पर आ चुका है क्रोनो, एंड दे आर ट्राइंग टू गिव लॉट ऑफ डैमेज टू द जिंक्यू जो कि खेल रहे हैं मार्सी। एंड उन्होंने कॉल कर रोकने की कोशिश तो करेंगे, बट कितनी देर अब ये खैर बनाएंगे। बट पीछे से एक और प्लेयर है जिसका नाम है स्माइल, और एक्स की HP कम नहीं हो रही है, और उतनी देर में नथिंग टू से का भी यहाँ पर TP बैकअप आ चुका है, और उन्होंने यहाँ पर फेंका है क्रिस्टल मेडन को। Was this a viable and wise decision? उन्होंने लिटरली अपने एक सपोर्ट को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया। एंड विस्पर ने अभी तक स्पीयर नहीं मारा है बेबी, बट जब तक स्पीयर मारा वॉल्स डाउन हो गई थी। अब ग्लिम्स कर विस्पर को वापस बुलाया और अब उनसे होगी मुलाकात। और इट्स अ 5-man गैंग कमिंग आउट फ्रॉम PSG साइड, एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स द Tier 1 टावर एट द बॉटम। रेडिएंट को ये बचाना मेरे हिसाब से इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज टावर की HP ऑलरेडी 20% कम है, एंड डायबोलिक जैसी कूलडाउन से हटेंगे दैट स्किल विल बी द प्राइम टू टेक डाउन दिस टावर। या डेफिनेटली, एंड आई मीन ये एक बहुत बड़ी भूल हो सकती थी, a little bit of an over engagement बीस्ट कोस्ट की तरफ से। बट चलिए देखते हैं कि इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होगा। एक और यहाँ पे पिक मिल सकता है PSG.LGD के प्लेयर्स को। सी स्माइल को धर दबोचा गया था इस न्यूट्रल कैंप के पास में, बट जीरा अपने आप को
खुद को सैक्रिफाइस किया ताकि अपने मिड को बचाएं। हाँ, और कलिंग ब्लेड का भी उनको एक बफ भी मिल चुका है, एक नंबर लिखा है जो एक एक्स्ट्रा ऊपर से पावर आता है, जिसके अंदर उनको एक आर्मर मिलेगा। आर्मर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप आप जब कॉल भी मारते हैं बर्सक कॉल, तो उसके वजह से भी आपको ऑलमोस्ट 40-50 आर्मर मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको डैमेज ज़्यादा नहीं पड़ता। बट अभी तो ब्लेड में लाने दो, ब्लेड में लाने के बाद एक अलग ही दृश्य देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी 1900 गोल्ड में प्रगति हो चुकी है यहाँ पर एक्स की, और एक्स को देखिए, ही इज़ लिटरली टैंकिंग द एंशिएंट, और उनकी HP हार्डली ही लेफ्ट राइट हो रही है। आई थिंक थोड़े से और क्रीप्स और उनका यहाँ पर जो ब्लिंक है दैट विल बी कंफर्म, वो आखिरी ड्रैगन कंफर्म करते हैं, उससे पहले ब्लिंक आ चुका है। अब वॉइड टाइनी इन प्लेयर्स के लिए जो ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा परेशानियों से भरने वाली है, बिकॉज ये एक्स हर बार स्मोक करके आएगा और सोलो पोटेंशियल किल निकालने का ये ज़्यादा रखते हैं तब। डेफिनेटली, एंड आई थिंक जितना लेट गेम में हम ट्रांजिशन करते रहेंगे उतना ज़्यादा परेशान ये एक्स यहाँ पे बीच कोस्ट की टीम को करेगा। टाइनी की एक बहुत ही अच्छी एंगेजमेंट, एक पिक मिलता हुआ बीच कोस्ट को, कोशिश रहेगी कन्वर्ट करने की, थोड़े और किल्स अगर हाथ लग जाते तो शायद एडवांटेज हो पाए, बट नहीं, गोजेरा भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बच पाएंगे? एंड आई थिंक दैट टाइनी माइट हैव हेल्प्ड हिम आउट एस्केप। PSG.LGD थोड़ा निराश रहेंगे, नहीं, पकड़ के ढूंढ के मारा है फेथ भी। बैक, उनको पता था कि इस वक्त स्टन आ सकता है, उनका ब्लिंक कैंसिल हो जाएगा। He let his knights tank that blink, उन्होंने ब्लिंक इन किया, और उसके बाद he secured that another culling blade। हर बार ये culling blade सर के बीच में लगेगा, दर्द अभी नहीं, थोड़ी देर बाद होगा जब वो एक्स अनकिलेबल स्टेट पे पहुंच जाएगा। ये गेम ऐसी स्टार्टिंग से ही क्रैट फीलिंग आ रही है कि बीच कोस्ट के हाथ आना बहुत मुश्किल है। This is going to be a very tough game for them too. यहाँ पर टाइनी को स्टेप अप करना पड़ेगा, बिकॉज वॉइड के लिए तो आसान गेम नहीं है। वॉइड यहाँ पे टाइनी एंड मार्स, दे हैव टू डू समथिंग, बिकॉज अगर ये जो चीज़ चल रही है अभी सर्वर में, अगर दे डोंट स्टॉप इट, ये गेम के अंदर एक अलग ही रुख ले आएगी, और एक्स विल बी द फ्लैग बेयरर इन दैट सिचुएशन। अब देखिए वॉइड के पास क्या आइटम है, वॉइड का जो आइटम प्रोग्रेशन है, वॉइड की जो नेटवर्थ है, वो अभी 4th पे है, 4th फ्रॉम द टॉप, और 3 प्लेयर उनसे ऊपर जो है वो सारे तीनों प्लेयर PSG.LGD के सबसे ऊपर कैरी हैं। उसके बाद एक्स आते हैं, फिर आते हैं उनके मिड तरीके से, तो वैसे मिड सेकंड पे होना चाहिए, बट यहाँ पर जो एक्स है उन्होंने अपने प्रदर्शन से लेन प्रेजेंस जीत कर पूरा गेम अभी अपने हिसाब से मोड़ रखा है। अगर एक्स इस गेम को कंट्रोल कर रहे हैं तो मतलब बाद में आपके सर के ऊपर एक्स तो नहीं बट तलवार लग भाला पड़ेगा जोर में। मैं मतलब वो कोई रेफरेंस दे रहा था कि तलवार आपके सर के ऊपर लटकेगी ऑफ एलिमिनेशन, तराजू पे लटके एलिमिनेशन। ऑलराइट, टीम फाइट तो नहीं बट एक गैंग यहाँ पे देखने को मिलता है। PSG को 2 प्लेयर्स का नुकसान हो सकता है इस गैंग में, अ लॉट ऑफ डैमेज डिश्ड आउट, बट स्टिल PSG सिर्फ एक ही अपना हीरो लूज करेंगे। ओके, यहाँ पे चेस करने की अच्छी कोशिश, उन्होंने मार्सी को स्पॉट किया, क्रोनो तो मार लिया, बट उनके पास डैमेज नहीं है, बट ये जैसे ही खत्म होगा, ओके उन्होंने स्टन यहाँ पर कर दिया मिस। अब ये जो स्टन मिस हुआ ना, गोजीरा को हॉन्ट करेगा, बस अगर ये गेम वो हारते हैं देन ये समझ लीजिए कि गेम 3 के अंदर PSG.LGD विल बी गोइंग फॉर अ क्लीन स्वीप, वो मौका नहीं देंगे। कॉन्फिडेंस डाउन होने के बाद इट्स वेरी हार्ड फॉर द न्यू टीम्स इफ यू कंपेयर अगेंस्ट देम यू नो विद PSG.LGD, तो उनको थोड़ा और सोच समझ के खेलना पड़ेगा। ये उनकी ही यहाँ पर फ्रैगिंग, बिकॉज क्रोनो कमिट किया गया उसको मार रहे हैं, अगर क्रोनो के बाद भी इफ यू नॉट एबल टू किल द पर्सन और प्लेयर देन समथिंग इज रॉन्ग विद द टीम। Something is always wrong with some team. Fair. But फिलहाल 6-8 की स्कोर लाइन चल रही है with PSG.LGD जो इस गेम में लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। मिड पे एक और स्कर्मिश देखने को मिलती है, काफी ज्यादा ब्रूटल हिट्स इस एक्स के झेलते हुए सी स्माइल पीछे से सपोर्ट भी आ चुके हैं थोड़ा और परेशान करने के लिए। टाइनी बिल्कुल सामने वाली टीम के बीच में इधर दबोचे गए हैं एंड दिस इज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल फॉर बीच कोस्ट। अगर ये टाइनी जल्दी ऑनलाइन नहीं आया तो जीतने की उम्मीद भी काफी टाइनी हो जाएगी। ऑनलाइन कैसे आएंगे जब उनके सर पे पड़ रहे हैं भाले, और जो नेटवर्थ है वो एक अलग ही स्काई रॉकेट स्पेसशिप की तरह आगे बढ़ती जा रही है। एंड PSG इज हैविंग अ वेरी गुड गेम, जैसा उनके कोच ने बोला था जाओ8 ने कि फेथ बियान का एक फेवरेट प्लेयर है एक्स एंड वी आर काउंटिंग ऑन हिम। सो इट्स फेथ बियान रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड हिज टीम टू द नेक्स्ट राउंड और next round of loser bracket so that
his journey, his team's journey in the International 2022 continues. The journey shall continue. मैं तो बार-बार वो नेटवर्थ का डिफरेंस देख के मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। एक्स के पास एक बड़ा एडवांटेज, लाइफ स्टीलर के पास बड़ा एडवांटेज और लेशरैक के पास बड़ा एडवांटेज। मतलब PSG.LGD तीनों की तीनों लेन्स डोमिनेट कर रही है इस वक्त। एंड फिलहाल जैसे हालात लग रहे हैं बीस्ट कोस्ट के पास कोई जवाब है नहीं इस बात का। नवक्रैट आई मीन हमने कॉम्स के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करी थी, इंग्लिश डेस्क ने भी, जो हमारे कॉलीग्स हैं ऑन दी इंग्लिश डेस्क, उन्होंने भी इसके बारे में थोड़े बहुत अपने व्यूज़ रखे थे। आपका क्या ख्याल है, अगर किसी तरह लेट गेम में यहाँ पे इस गेम को ले जाए बीस्ट कोस्ट, क्या पॉसिबिलिटी होगी उनके कमबैक की, या फिर तब भी ऐसे ही हालात चलेंगे और जितना लेट जाएंगे PSG उतना मारेगी? यहाँ पर PSG का जो लाइनअप है it's a very nice balance of physical, magical and tank. यहाँ पर Axe is a beautiful tank. इस वक्त लेशरैक मैजिकल हीरोज के अंदर मेटा में बहुत ऊपर है और it will be very stupid of us if we underestimate or neglect the life stealer. अब ये देखिए इन्फेस्ट बॉम्ब आ चुका है, यहाँ पर ब्लिंक है उनके पास ऑलरेडी एक्स के पास and he is going for that call. कॉल मारी because उनको पता है क्योंकि why did he hit that chrono on X? केवल कभी-कभी कुछ अलग ही यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इन्फेस्ट बॉम्ब था यहाँ पर और अब किसी भी सिनेरियो में यहाँ पर मार्स के बचने की कोई भी चांसेस नहीं है। बट ये जो वो केवल why did he come back? Why did he hit chrono on X? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मेरा जहन पूछना चाहता है बट वो जवाब अभी मुझे इस गेम के अंदर मिल गया। एंड आई थिंक जवाब आपको गेम 3 में मिलेंगे क्योंकि I got a feeling that this game will go to PSG.LGD. अभी थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे कि what if ये हार जाएगी चाइना का। वो तो मैं तो कुछ भी बोलता हूँ, आप मेरी बात सुनते ही। मतलब आपने अपने स्टेटमेंट्स पे अगर आप देखिए हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती। और फेजबियान को एक और किल उनके फेवर के अंदर उनका काउंटर रिलीज को ढेर सारी किल दिला रहा है। यहाँ पे इस पर फेजबियान को टारगेट करना आई थिंक वोंट बी नेसेसरी जॉब बिकॉज ही इज वेरी टैंक। उसके पास ऑलरेडी अभी भी है आइटम, दैट आइटम नेम्स इज वैनगार्ड। बट अब आते हैं स्माइल मिड थे, इसका मतलब उनका जो फर्स्ट और सेकंड लेवल है स्किल वो हाई मैक्स हो रखा है और वो जितना डैमेज आउटपुट कर रहे थे वो काफ़ी था यहाँ पे एक्स को मारने के लिए। वो किया, एक्स का पिक ऑफ करा एंड टीम के अंदर अब स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ी बिकॉज एक्स अब कुछ देर के लिए आराम। 21 सेकंड 20 सेकंड एक्स को रेस्ट करने मिलेगा। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेस्ट एज वेल। जितना उन्होंने हैवी लिफ्टिंग करी है गेम के शुरुआती 17 मिनट में, थोड़ा आराम तो बनता है लेकिन कहीं गलती से ये ना हो कि जितनी देर ये आराम कर रहे हैं एक और टीम फाइट ब्रेकआउट हो एंड PSG.LGD लूज अ फ्यू मोर ऑफ देयर प्लेयर्स। पॉसिबिलिटी ऐसा होने की बहुत कम है क्योंकि इंस्टेंटली PSG.LGD सिर्फ अपने हाफ पे वापस ट्रांजिशन कर चुकी है। बीस्ट कोस्ट के प्लेयर्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा बड़ा रिस्क तो नहीं लेंगे कि सामने वालों के जंगल में जाके या उनकी लेंस पुश करके ज़बरदस्ती कोई फाइट पिक करने की कोशिश करें। लेट्स सी, विस्पर इस वक्त फेद बयान के ठीक सामने खड़े हुए as he is back in the game. ये टॉप टियर 1 जल्दी गिरता हुआ हमको नज़र आ सकता है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ दिक्कतें बढ़ती चले जा रही बीस्ट कोस्ट के लिए। क्रिस्टल मेडन इससे पहले कि मैं बोलता लड़ाई का हिस्सा बनने वाली है, उनको ख़त्म करके लड़ाई से बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये मार्स किसी तरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रीज़ के पीछे जाके छुपे हैं बट PSG.LGD दे डू नॉट केयर एंड वाई शुड दे। उनको उनका टियर 1 मिला, अब वो जाके न्यूट्रल्स लेंगे एंड इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि अभी जिस तरह से बीस्ट कोस्ट ने पहला गेम जीता था ऐसा लग रहा था कि दे वुड फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे वुड बी डूइंग वेरी वेल सेकंड गेम के अंदर भी। बट PSG बीइंग PSG डूइंग PSG थिंग्स, देखिए ढूंढ के मार रहे हैं और यहाँ पर कोशिश काफ़ी अच्छी थी, कलिंग बेट से खत्म करना चाहते थे। आई थिंक दे शुड लेट फेथ बियान टेक ऑल द कलिंग बेट किल्स जिससे कि उनकी आर्मर में एक अच्छा खासा एडवांटेज मिल सके। बट ये देखिए ना स्कोर लाइन देखिए 15-9 19 मिनट में 15 बार 15 किल्स निकाल चुके हैं एंड दे हैविंग अ वेरी नाइस गेम। अगले 5 से 10 मिनट के अंदर आई थिंक ये गेम का जो डिसीजन है वो निकल जाएगा एंड हम दोनों को पता ही है कि कौन ये गेम जीतने वाला है बिकॉज दिस एक्स इज़ टू फैट टू हैंडल। और वहीं पे लाइफ स्टीलर की बात करें 20 मिनट के अंदर उनके पास फेस बूट्स है, उनके पास डेसोलेटर है और उनके पास कोरोजन ऑफ है विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। और वॉइड के पास अगर बात करें वॉइड के पास मिडास है, साथ साथ मेलस्टॉर्म एंड पावर थ्रेड जेफाम इनका बुरा नहीं है बट यू नो द डील अभी बिकॉज एक्स के पास ब्लेड मिल आ चुका है
एक्स को करना क्या है, ब्लिंक करेंगे, कॉल मारेंगे, ट्रेडमिल खोलेंगे और फेसलेस वॉइड की जो अटैक स्पीड है उसकी वजह से वो खुद ही ढेर सारा डैमेज अपने पे इन्फ्लिक्ट कर लेंगे और वो एक आसान काउंटर हो सकता है फेसलेस वॉइड का अभी के लिए। दैट मींस जस्ट फॉर दिस मोमेंट। लेट्स सी ये एजेस के अराउंड अगर प्ले मेकिंग करी जाए, जो कि PSG डेफिनेटली करने वाली है। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा केयरफुल यहाँ पे रहना पड़ेगा बीस्ट कोस्ट को। मज़ेदार बात यह है कि बीस्ट कोस्ट ने किसी ना किसी तरह थोड़े बहुत किल्स तो उन्होंने भी उठाए हैं। 9-15 की स्कोर लाइन चल रही है, बट PSG के पास 7000 गोल्ड का एडवांटेज ऑलरेडी आ चुका है। ऑल थैंक्स टू दैट लाइफ स्टीलर एंड एक्स, जो कि अर्ली स्टेज में उन्होंने अपना गेम प्ले दिखाया। अब इस चीज़ के चलते लेट गेम में ये कैरीज और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, स्पेशली दैट एक्स, जैसा क्रैट बार बार मेंशन कर रहे हैं, इज गॉटन सो फैट दैट एट दिस पॉइंट PSG को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो एक्स अकेला डाइव मार रहा है या उसके साथ कोई है भी। ऑब्वियसली बात है 1v5 डाइव मारेंगे तो कुछ कहा सुनी हो सकती है, बट लुक एट दिस, 3 प्लेयर्स हैं उनके सामने, ही स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ एवरीवन, और फिर भी काफ़ी कुछ कमिट करना पड़ा टू टेक डाउन दैट एक्स, एंड वो एक को मार के गए हैं। और वो मतलब ही इज अ कोर 3 एंड ही गॉट अ कोर 3 किल, सो इट्स ओके, चलता है। और यहाँ पर मार्स की अगर बात करें, मार्स अभी 5th नंबर पे है और 2nd पे है टाइनी के साथ प्रॉब्लम यही है, इफ़ यू आर प्लेइंग मिड टाइनी अनटिल अनलेस आपकी टीम आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए देने चुके, बट द गुड न्यूज़ अबाउट द टाइनी इज टाइनी के पास ब्लिंक है और इको सेवर है। दिस इको सेवर एंड ब्लिंक कॉम्बो इज अ ग्रेट थ्रेट टू 2 प्लेयर्स, लशरैक, Marcy and Disruptor. Literally one shot will be enough to take him down. But Gujira काफ़ी ज़्यादा कम HP में, one more shot will be enough. उनको गेम से बाहर निकालेंगे and Marcy ने सीधा भागने की कोशिश करी है। वहाँ से जो टाइनी है वो रफू चक्कर हो चुके हैं, उनको पता है कि इस वक्त PSG बहुत ज़्यादा गुस्से में है और PSG किसी को भी माफ़ नहीं करेगी। Oh, what was that? I did miss that one element. लाइफ स्टीलर के पास फेसबुक है, आमलेट है, बैशर है, डेसो है, करोजन ऑफ है और सिचुएशनल और अर्ली फेज आइटम्स इनके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे जैसे हम 25-30 सीधी तरह बोली लीजिए, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, पैसा है और माँ भी है। माँ का तो आशीर्वाद ही काफ़ी होता है। बट यह सब मुश्किलें, प्रॉब्लम, दुख, पीड़ा जो हमारे शर्मा जी बोलते हैं, वो इस वक्त ढेर सारी है इस गेम के अंदर। और एक्स को देखिए कैसे पागल कुत्तों की तरह ही इज हंटिंग डाउन ऑल द एनिमीज की भाई दिख जाओ, आत्मा खींचने का काम मेरा है। विस्पर अभी स्मोक कर कर धीरे धीरे सुमड़ी में आगे जा रहे हैं। एक बार वो करीब को हाथ लगा दे, जैसे उन्होंने यहाँ पे लगाई, ओके उन्होंने स्पीयर मारा और यहाँ पर स्पॉट होगी मार्सी एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट ओके 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 माना तो है सिक, जहाँ से होना चाहिए वहीं से है तो थिक एंड ही गॉट द वॉइड आउट। एंड यहाँ पे टाइनी को लग रहा होगा कि ये इम्पोर्टेंस उनको मिलने वाली है, बट ऐसा नहीं हुआ। पहले वॉइड की पर्ची काटी, उसके बाद उन्होंने डिक्स की पर्ची काटी एंड दिस टाइम they got the smile too and nothing to say is saying notice me if you can, I'm busy farming boy. Or this axe is running towards the tier 3. It's just 23 minutes on the clock and they are already so confident about the game. Network का जो difference है वो already 10,000 gold छू चुका है। 10,000 तो मेरे ख्याल से बहुत पेरों की नेटवर्क नहीं होगी अभी तक, जितने का डिफरेंस उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। कॉल मार्कर जो हमारी क्यूटी थी, क्रिस्टल मेडन, दिस इज द बिगेस्ट आई विल से जो बैड थिंग जो लोग करते हैं अरे कि हर बार जब भी इनको डिफेंड करना होता है, नथिंग टू से के बाद एचपी बहुत कम है, उन्होंने ब्लड स्टोन मारकर अपने आप की एचपी पूरी कर ली, बट ये कब तक कर पाएंगे। बट ये बी के भी 1 2 3 आई वाज होपिंग कि एक्स अंदर जाके कॉल मारने वाले, बट ही इज वेटिंग फॉर द एग्जैक्ट प्रॉपर टाइम। यहाँ पर उन्होंने देखा, यहाँ पे देखा, इट्स अ परफेक्ट चांस। आई थिंक यहाँ पे टाइनी ने उनका ब्लिंक कैंसिल कर दिया, बट इसके वजह से हो गया। अभी कॉल मारने का अच्छा चांस आ चुका है, बट टाइनी यहाँ पे पिक ऑफ हो चुके हैं। वो उनको पता है कि उनको कॉल किस पे मारनी है, उनको कॉल मारनी है यहाँ पर फेसलेस वॉइड। इफ दे मैनेज टू गेट फेसलेस वॉइड वन मोर अगेन, आई थिंक देयर इज अ ह्यूज चांस दैट यहाँ पर जीजी कॉल आराम से हो जाएगा। दैट डैमेज विद लाइफ स्टीलर, लिटरली उन्होंने 2 शॉट करा और कॉल मारकर यहाँ पर फेसलेस वॉइड को पकड़ लिया। अगर डिसेबल नहीं किया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। टाइम ऑफ मारकर वो चाहते हैं कि डिसरप्टर को मारने जाए, बट उन्होंने इंस्टेंटली ग्लिम्स मारकर उनको फॉल बैक करने पे मजबूर कर दिया है। एंड गॉड्स रिब्यूक की वजह से लाइफ स्टीलर एंड मार्स को ढेर सारा डैमेज यहाँ पे टैंक करना पड़ा है। इज वेटिंग फॉर दैट ब्लिंक, बट वहाँ पर क्रिस्टल मेडन की जो बैक टू बैक स्किल्स आ रही है उसकी वजह से वो ब्लिंक बार बार कूल डाउन पे जा रहा है। और आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, दे लिटरली
OVERCOMMI ओवर कमिट कर गेम के वारे निहारे लगवा लिए। स्पेल आउट करके बताया कि क्या गलती हुई यहाँ पे PSG/LGD की तरफ से, एंड आई थिंक they should be eliminated because they don't deserve, you know, champions, they don't make such mistakes. क्राड एक गलती करी है, क्या बोल, you know, like you live in a binary life, man, either it's 1 or 0. ठीक है, Time is money. देखिए उन्होंने भी कहा टाइम इज मनी। Dire's middle tower is under attack. ठीक है, It's like I'm hurt, man. I'm hurt. Emotions hurt हो गया। You had a lot of hopes from PSG. From everyone. Yesterday my hopes were shattered. You had a great time. जिंदगी में कभी हार है कभी जीत है, Are scanning. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही और हार कर जीतने वाले को हम बाजीगर कहते हैं। not with talent. यस, सबको Where is Mr. Perfection? Mr. Kevin Fixes O'Leary. Kevin is O'Leary missing. You want me to call him? Let's call. Not right now, not on air. Crowd match चल रहा है important, PSG तोड़ रही missing है। my expert. When जब उन्होंने कल PN Flags को बोला ना कि late game वो Chinese होता है, I was very astonished because with that confidence, you know, मतलब आप offend हो गए थे उस he can statement be सुन a के। great salesman, मतलब कुछ भी बोल दे। दो चीजों पे आप ऑफेंड हुए, पहला तो RTC को उन्होंने TI जिताया। हाँ, RTC TI जीता है 2015 में और वो RTC का फैन है। आज वो कहते फियर क्या कर रहे थे उस टीम में? अरे फिक्सेस की माया, फिक्सेस ही जाने। फिक्सेस है। फिक्सेस के अंदर एक एक्स फैक्टर है जो फिक्सेस को फिक्सेस बनाता है, उसको खुद नहीं पता है, बट फिक्सेस को पुलिस वाले और MCD वैन ढूंढते हैं। पर क्यों? मतलब he is very cute, he is very nice. पुलिस वाले और MCD वैन क्यों? क्योंकि ये क्या कॉम्बो है? Stray animals are not allowed अच्छे एरियाज में। और पुलिस वाले It's okay, it's like it's some bad jokes. But yeah, Gojira यहाँ पे वेंडेटा मारकर अभी स्काउट करने की कोशिश करेंगे, but I think Roshan will be up any second and Elven Tunic level 3 neutral item है, a great item, movement speed मिलती है, evasion मिलती है और यहाँ पे attack speed भी मिलती है इसके साथ। Life Stealer can be a good bearer of this item. Philosopher's Stone यूज़ कर रहे हैं why? इससे क्या होता है कि आपका जो माना पूल है वो 200 बढ़ता है, आपका अटैक डैमेज 30 कम होता है और आपका GPM इंक्रीज होता है। तो इट्स अ गुड आइटम, मैं टिंकर पे यूज़ करता हूँ, इट्स वेरी यूजफुल बिकॉज वहाँ पे मुझे फिजिकल अटैक नहीं करना होता। और अभी जितने 27 मिनट चल रहे हैं, 27 मतलब मेरे पास अभी सेप्टर होता, ईथर लेंस होता और 2-3 लेवल का डेगन होता और मैं टाइनी नहीं तो क्रिस्टल मेडन नेक्स्ट एंड मार्स वगैरह को भी मेल्ट कर रहा होता। बट इट्स ओके, व्हाट आई एम सेइंग इट्स वैलिड and it's achievable in 3500 MMR. चलिए चैट से थोड़ी बात करते हैं। चैट से बिल्कुल चैट से बात करते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं इतनी सुबह, बताइए हम। आर यू गाइस एट वर्क? ओह हैप्पी दिवाली, छोटी दिवाली आज, सो हैप्पी छोटी दिवाली। जान से पहले हम आपको मिलेनियल्स के लिए और एवरीवन हु इज वर्किंग उनके लिए कोई दिवाली नहीं होती, एक बहाना होता है घर वालों के साथ कुछ टाइम बिताने का। बिकॉज आज के टाइम पे यू आल्सो नो दैट छुट्टीज आर जस्ट टू हैव प्लान्स फॉर द फ्यूचर। नहीं, सोने के लिए होती है छुट्टियां। मैं तो छुट्टी मेरे ख्याल से आई थिंक आपको आज शाम तक कल का शेड्यूल आ जाएगा कि कल कौन सा शूट होने वाला है। हाँ, तो एंड आप उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और जितने भी लोग अभी गुड़गांव में हैं, डोंट प्लान एनीथिंग इन दिल्ली, अराउंड दिल्ली, बिकॉज दिल्ली के अंदर फायर क्रैकर्स फोड़ने वाले बहुत ज़्यादा। यस, डोंट बर्स्ट क्रैकर्स गाइस। Yeah, say no to crackers. Say no to crackers. Say no to drugs, say no to crackers, and say no to every bad thing. You know, कभी-कभी जब बड़े लोग कुछ बोलते हैं, I think बिना किसी डिफरेंशियल के आपको मान लेना चाहिए। बट एक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है लाइफ स्टीलर ने, and he is behaving like a मिल्का सिंह। उन्होंने यहाँ पे स्पॉट कहाँ से आए हैं देखिए। ये देखिए, ये लगाया कॉल एंड एक्स ने यहाँ पर धर दबोचा यारे हमारे केवल को, और मौका तक नहीं मिला। 394 गोल्ड, 278 गोल्ड प्लस 468, 4 लोगों में बंटवारा होगा। फेथ बियान के पास ढेर सारे कलिंग रेट किल्स ऑलरेडी आ चुके हैं और 9000 की नेटवर्क बीच में 10,000 पहुंच गए थे, बट उन्होंने फिर से माफ नहीं करा। और ये देखिए एक और बट से हेडशॉट। एंड कलिंग रेट की कुछ खासियत ऐसी होती है कि अगर कलिंग रेट से किल निकलती है, देन कलिंग रेट सीडी पे नहीं चढ़ता, आपका वो रिफ्रेश हो जाता है सो दैट यू कैन यूज इट, और आपको एक मूवमेंट बूस्ट भी मिलता है। और जो हमारे रोशान वाले भाई साहब हैं,
वो रोशान भी आ चुका है 4 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट थिंग फ्रॉम द PSG मैं तो खुश हूँ, मारो रोशान व्हाट अ ऑर्गेनाइज्ड गेम प्ले। Yeah. मतलब उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा यहाँ पर कि कुछ और हो सकता है। बट देखिए कैसे आ रहे हैं। अब होगी रोशान की पिटाई। अगले 5 सेकंड के अंदर रोशान को 2 बार मारने का दम रखते हैं इस वक्त। इन्होंने जामे है रोशान भाई साहब ने 2019 में मेरे और हमारे उस टाइम पे कलीग होते थे मिस्टर चार्ली के बहुत पराठे चुराए हैं। द गाय डिजर्व्स टू बी बीट। चार्ली को क्रिएटिविटी थी, बिकॉज़ चार्ली को जब भी बोलो उनका पूरा सुई घूम के पराठों पे आ जाता था। एंड आई रिमेंबर दैट जोक दैट इन फेमस मैजिक यू पुल्ड ऑफ। यू गॉट बैन। ओह या ग्रीन स्क्रीन। या इट वाज ब्रिलियंट। मैं वो शैडो प्ले लगा के स्पेशलिटी अबाउट अ नॉडविन टैलेंट इज दैट वी कैन क्रिएट एंटरटेनमेंट विदाउट स्पेंडिंग। कहीं से भी कुछ भी निकाल देते हैं। We can do anything. We are, you know, रणवीर सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था हम तो भांड है। भांड क्या होते हैं कि उनको पैसे देते हैं फॉर द एंटरटेनमेंट। We are typically those people. You tell us the game, you give us, you know, good hours to study that, and we will create entertainment. बट अभी फिलहाल एंटरटेनमेंट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा PSG प्रोवाइड कर रही है। क्रैट कॉज बहुत पिटाई देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है डोटा नहीं WWE देख रहा हूँ मैं। भगा के मारा जा रहा है यहाँ पे 20 कोस्ट के प्लेयर्स को। यार चल रहा था ये हमारी पटकी जीजी थी और वहाँ पे माथे के बीच में पड़ी है वो। इट्स नॉट हेल इन अ सेल, इट्स जस्ट हेल। वो कौन सा होता था हेल इन अ सेल के अंदर? होता था लास्ट मैन स्टैंडिंग और रॉयल रंबल ऊपर से फेंकते थे रस्सी के। यही है ना कि 5 लोग एक को मार रहे हैं अंदर। ओ हैंडीकैप मैच। हैंडीकैप में होते थे कि 2 अगेंस्ट 1 होते थे, 3 अगेंस्ट 1 होते थे। ऐसा क्यों ही करते होंगे फिक्सिंग। टाइटन सिल्वर मार्सी को टाइटन सिल्वर मिला है। ये आइटम एक्स पे बहुत सही रह सकता है बिकॉज़ इससे स्टेटस असिस्टेंस भी मिलता है, आपका डैमेज भी बढ़ता है और एक्स का फार्म रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। द नेक्स्ट आइटम एक्स इज गोइंग फॉर इज इयॉन डिस्क। इयॉन डिस्क मतलब अगर कोई सरप्राइज एलिमेंट उनको पकड़ लेता है और उनको बिल्कुल एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर एक्स अपने आप को बचा पाएंगे। बट एक्स एक पोजीशन 3 हीरो है, इसका मतलब वो फार्म के अंदर वॉइड, लाइफ स्टीलर और लेशरैक के साथ कीप अप नहीं कर सकते हैं until unless because he is the one जो हमेशा आगे जा रहे हैं। ये देखिए उन्होंने ब्लेड मिल ऑन करा बट आई डोंट थिंक इट्स इनफ और एक कलिंग ब्लेड और आएगा बट दैट बैश फ्रॉम आमे। ये पूरा गेम ही पलट गया। बैक टू बैक 2 बैश मार चुके हैं यहाँ पर और अभी मुझे देखना है कि एक्स के पास 16 कलिंग ब्लेड है। 16 कलिंग ब्लेड है। Is it time to call एक्स GG? का जो आर्मर है दैट इज 10 + 38 + 43 हो गया क्योंकि ही इज अराउंड मे बी असॉल्ट गाय। Yeah, 43 + 11. This axe is buff. You can't touch this axe. इतना आर्मर मेरे ख्याल से किसी का ही होता है भाई। मे भी इतना आर्मर मेरे ख्याल से एक ही प्लेयर टच कर सकता है इस गेम के अंदर। That player is, अब अगर आपने बता दिया आपको 1000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। कल परसों मैंने उस प्लेयर पे स्पेशली बोला था कि उस प्लेयर की जान होती है उसके और उससे वो आर्मर बढ़ता है। ओह बच बच की थर्ड स्किल फ्लैशिंग की मैजिक। हाँ आई जस्ट रिमेंबर। डैमेज रिडक्शन होता है। एक ऐसा प्लेयर जिसकी थर्ड स्किल में पॉइंट डालने से न्यू टू डोटा यू नीड टू गिव मी मोर रैमिंग पावर। यू आर माइक रॉस मैन। यू हैव अ फोटोजेनिक मेमोरी। हो सकता है उस टाइम पे मैं ध्यान न दे। उस टाइम पे यू मस्ट बी यूजिंग टेंडर। नहीं ऑर्डरिंग फूड, ऑर्डरिंग रेड बुल्स, टिम्बर्स। रिएक्टिव आर्मर। एवरी रिएक्टिव आर्मर इज अ स्किल एवरी टाइम एनीवन टच हिम। जैसे एक क्रीप ने उनको हाथ लगाया, एक आ गया चार्ज। अगर 10 क्रीप ने हाथ लगाया तो 8 चार्ज मैक्सिमम होते हैं बट हर एक चार्ज के साथ आर्मर भी ऐड होता है। अगर उन्होंने शिवाज वगैरह बना लिया तो ही कैन टच 60 + आर्मर। बट ये दोनों के अंदर डैमेज देने की कोशिश उन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रप्टर को मारा। बायबैक आया मार्सी की तरफ से बट अभी तक एक भी कोर PSG का डाउन नहीं हुआ है बट ज़्यादा देर यही सर्वाइव करने के लिए पॉसिबल है। बट एंड फाइनली GG कॉल आ चुका है। मैंने बोला था 23-24 मिनट पे बोला था कि अगले 5-10 मिनट के अंदर यहाँ कहानी खत्म हो जाएगी कॉज PSG इज नॉट गोइंग टू फॉरगिव Beast Coast for the game number 1. Game number 1 के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी but game 2 was a complete wash off and the boy from the Beast Coast. Yeah. He is stunned. He is astonished. He is in deep vein. What just happened? They were so strong. Zinkyu, Vi, Faith Beyond. Nothing to say, Aname. They were fantabulous. They came, they conquered, and now they are leaving. But ये एक BO3 सीरीज है जिसमें अभी स्कोर लाइन हो चुकी है 1-1। अभी भी मौका है यहाँ पे बीस्ट कोस्ट के पास और इनफैक्ट PSG.LGD के पास टू लाइक क्लोज इट आउट एंड मेक श्योर दे विन। लेकिन उसमें लगेगा एक और गेम क्रैट। हमारी
कल हमारी जितनी लोअर ब्रैकेट की मैचेस थी सारी गई थी आखिरी गेम तक। हमारी अपर ब्रैकेट की दोनों मैचेस खत्म हुई थी 2-0 और आज तो 4 लोअर ब्रैकेट मैचेस हैं एंड आई थिंक आज हमको बहुत सारी डोटा देखने को मिलेगी। आई थिंक कि हैवी चांसेस है कि यहाँ पर जो डोटा है वो बहुत सारी होने वाली है बिकॉज अब जितनी भी टीम्स हैं हम टूर्नामेंट के एक बहुत आगे वाले स्टेज पे आ चुके हैं। इसका मतलब जो सारी टीम्स हैं दे आर ऑल प्रिपेयर, दे नो व्हाट दे वांट फ्रॉम दिस टूर्नामेंट एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट। PSG अनफॉर्चुनेटली द अपर ब्रैकेट्स के अंदर एक अनफॉर्चुनेट लॉस की वजह से दे हैड टू कम एंड लूज अ ब्रैकेट, बट दे आर गोइंग टू क्रिएट अ ब्लड बाथ हियर लाइक अभी जो उन्होंने किया। So we are going to witness it again. But Faith Bian, you know, he had a great game because 16 से ज़्यादा कलिंग प्लेट थे उनके पास and he was on a roll. और मेरे ख्याल से टीम भी उनको अलाउ कर रही थी कि बार बार वो जाकर वो करेंगे, बट ये इस टाइम पर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि थोड़ी सी तो ओवर कमिटमेंट यहाँ पे करी उन्होंने। टावर तोड़ा, सब सही था, बट उसके बाद ये देखिए यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले गुजीरा को पिक ऑफ करेंगे, डिस्पोज करने की कोशिश, पर उससे पहले मार्सी की एचपी काफी ज्यादा कम हो गई थी और बीकेबी ऑन करके दे जस्ट वेंट इन। मतलब कोई सा भी कुछ भी कर लीजिए तो इस वक्त फायदा नहीं होता। कैसे मार रहे हैं और फायदा उठा सकते थे, बट इट वॉज टू लेट टू से सॉरी आई बिलीव। Is it too late to say sorry? Yes. Come on. आगे क्या था? पूरा गाना नहीं आता। Yeah, like Justin Bieber is very fluent with his accent and all the lyrics. Accent तो एक ही शख्स के पास है। नीरज सांगले। Yes, Mr. नीरज सांगले। नेक्रो, जो कि लेक्रो के बहुत बड़े फैन थे, ऐसा हमें पता चला है। और इसलिए उनका नाम नेक्रो है। उन्होंने लेक्रो का फेथ बियान का स्कोर तो देखिए जी। अरे 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 बाबा लो। It's 24-10 नेटवर्थ है यहाँ पे। This proves कि you don't need farm, ठीक है, आपके फार्म है इट्स ओके, बट अगर आपको उस लिमिटेड फार्म से भी बट एक गलत है ग्रैड एक्स का साइज देखिए, इतने बड़े हीरो हैं, हाउ लाइक इट्स इंटिमिडेटिंग। मेरे जैसा इंसान कैसे टिक पाएगा? ड्रो रेंजर अगर एक डिसेंट एज में फार्म हो तो उस एक्स को बीच में से काट सकते। तो ड्रो रेंजर के पास तीर है, वो बेचारा कुल्हाड़ी चला रहा है। वो फिर साइज भी तो है ना, तो तीर तो दूर से लगते हैं ना। अब साइज बनाए तो थोड़ा तो बचेंगे, बट यस दिस इज इंटरनेशनल Dota 2 चैंपियनशिप। यू कैन सी द नेम्स, दिस इज PSG, दिस इज बीस्ट कोस्ट। और स्कोर है गेम नंबर 1 जीता, इन्होंने गेम नंबर 2 जीता, मतलब ओके इन्होंने गेम नंबर इन्होंने गेम नंबर 1 जीता, इन्होंने गेम नंबर 2 जीता, अब 1-1 हो चुका है। अब देखते हैं कि 2 किसकी तरफ जाएगा। जी आई थिंक थोड़ी देर में हमारे साथ जिनको आप काफ़ी देर से याद कर रहे हैं, आप उनको फ़ोन भी करने वाले थे, वो इन शख्सियत जुड़ेंगे, हमारे डोटा एक्सपर्ट जिनको इस गेम के बारे में सब कुछ पता है। मतलब उनको सब कुछ पता है, उनके हिसाब से तो आरटीजी ऑलरेडी ही मेड आइस फ्रॉग। हाँ या मुझे तो कभी लगता है कि आइस फ्रॉग एक ऑनलाइन पर्सनालिटी जो है वो जो फिक्सेस है। हाँ ही इज गुड विद डेवलपमेंट। ओह यू नेवर नो, जो आइस फ्रॉग है सबवर्जन हमारे आ गए। ही इज हियर गाइस, आप आ जाइए, आप ऐसे आ जाइए लाइव बैग उतार के आ जाइए प्लीज। यू नो यू आर द चीफ गेस्ट, एवरीबॉडी लाइक यहां पे लिटरली वेयर इज फिक्सेस एंड हम बोल रहे थे इट्स लाइव फिक्सेस, यू आर डांसिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन वाचिंग यू राइट नाउ। Is this the क्या फेस्टिवल? It's a Dota festival and he's celebrating. Happy छोटी दिवाली fixes भाई। Yes, happy दिवाली। हेडफोन पहन के हमारे दर्शकों को beautiful jacket you are wearing fixes. Is it a you're spreading love. Here you go. ये रही। आपको कोई सुन नहीं पा रहा था, so you need to wish our friends again. In fact, your friends again, जो सुबह से I'm pretty sure आपके लिए information gather कर रहे हैं। People messaging us कि we don't want to watch you guys. Fixes को लाओ। Fixes को लाओ। इसीलिए हम How you feeling, you know? Like Johnny told me that आपकी थोड़ी तबीयत खराब थी। सोते नहीं है टाइम पे। तबीयत का लेफ्ट राइट हो जाता है। I think you need to learn how to manage your personal love life and he is pushing rank personal life के लिए तो मतलब पूछिए मत। Personal life ये जिएंगे जब one advice देवी और सज्जनों, never get back with your ex। ओह ठीक है, एंड ये आपके लिए भी लागू होता है। आप क्यों हंस रहे हो? Like a few months back, like maybe 2-3 weeks back, and you were so dedicated. I need to sort this out. I'm a happy man. What are you saying? I'm a happy man. नहीं, यही इंसान गलतियों की पुतली है। देखिए अपनी बात कीजिए, हम तो सॉर्टेड हैं। आप अपना देख लीजिए, मेरा अपना सही है। मेरे ठीक है, आप बिल्कुल ना बोले। आई एम वेरी हैप्पी। अरे कृपया ना बोले। आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, हम डोटा की बात कर रहे थे, हमने डोटा के बात डोटा करने के भी लिए एक फॉर्म ऑफ प्यार है। डोटा इज लव। डोटा इज लव। डोटा इज डिवाइन लव। And it will never leave you कभी नहीं unless छोड़ Dota 3 आ जाए। I think Dota ही गेम है जिसने मुझे ऑड टाइमिंग्स में कास्ट करवाया गया।
But guys, हमारे favorite person is doing something fun. So Action Slacks. Asenia. Well, Casey. I feel like we've made a mistake because we came out into the crowd in an attempt to find the youngest Dota fan here, and I shouldn't have brought you with me because you're a little too loud for this youngest fan. Are you ready for it? Yes. Can Can you step aside for a moment? I will, please. Can I get everyone in the arena to be as quiet as possible? Great, just like normal. All right, ready? The youngest Dota fan is right here. Hello, my friend. How you like it here? What's the fan? How old? How old? What's the team? Well, we are kind of split parent-wise. Mom is with Liquid and I'm with the OG. Little baby, I want you to give me a high five now if you want Liquid. All right, now baby, I want you to give me a high five if you want OG. Wow, you heard it here first. Oh my gosh, you guys love Dota so much, you brought an 8-week-old baby. Yes. He came here 10 weeks ago. He came to the world and he was just mega excited. We were contemplating not going to CI, but he's been very good the whole time. So you barely heard him, I hope. Yeah, no, if we can hear the baby, we're not doing our job, okay? We need to be making a little bit more noise than that, am I right? This is the only child I've ever seen not afraid of slacks. Yes, but even Children trust I'm me. a little afraid of him. Oh, slacks, they're afraid of you, but Yeah, the baby absolutely. isn't. All right, we've seen the youngest, okay? Who's the oldest person in the arena, all right? And I'm talking to mental maturity. Who believes that they are the most ancient Dota fan here? Who should we defend? Anyone? Would anyone like to enter the contest? We'll start at 100. Do I have 100? Do we have 100 years old? Anybody in the crowd? 100, 99, 99, 99, 40, 60. Any 60s? Why'd you go from 40 to 60? Hey, that's a good point. So, 30s? Any 40s? No one wants to admit their age. Myron, how old are you? 58. Ah, my God, ladies and gentlemen! Give me that camera, Myron. It's all good. Myron, our cameraman, the oldest Dota fan. I'll take it. Yeah, give her the Myron, camera. give me your camera. Come on. We do this every time. Yes, it's time for our yearly Myron hit. Back up. Myron? 58, and what was the other question? That's it. I don't want to hurt your old brain. Thank you so much for being a Dota fan, Myron. Anything out there to say to the other ancients? What? All right, fantastic. We'll throw it back to you. Dota 2, a generational experience. It wouldn't be a TI if Katie didn't take the camera from Myron and we got to see Myron on the camera, on the view there. And admitting his age, you know, I'm surprised nobody in the crowd was like, yeah, I guess I'll show my age. Nobody wanted to say anything. Touchy subject among Dota fans. Mental age, though, I feel like we're very mature for, you know, for gamers in terms of mental age. Because we have to deal with so much. You're basically being a psychiatrist every time you enter a Dota game. Yeah, exactly. You need to be able to, you know, say, we got this, even though you don't believe it a lot of the times. But in the end, you know, it pays off. But Jankus had a cool comment. Yeah, I had a really great comment about the baby. Oh. Yeah, I didn't know that Arteezy was an OG fan. That's quite surprising to me. I would say is the comment that I made that he's making me say live on air now. So sorry about that, Arteezy. I'm a big fan actually of you. So very good. It is. I mean, it is heartbreaking that relationship. It's not going to last because one of the two is going to knock out the other one, and that's painful. How are you going to live that down? But that relationship can last because there is love and friendship between those two teams because of Taiga and the rest of Liquid. So I believe in them. Yep. Yeah. Okay. Well, love secured for that relationship for sure. Okay, we got to prepare for this third and assigning game here because there's a lot on the line. There's pride on the line. There's money on the line, placements on the line, maybe even careers on the line. I feel like we got to talk about this a little bit because we talk, of course, a lot about Matu, it being his last TA, but we also have to talk about Faith Beyond because they're basically tied now in their faith in terms of this is their last TA. They said they are going to retire. We never know how long people are retiring for. There's a little bit of a trend of coming back out of retirement.
retirement, but I do want to give a lot of respect to former TI winner as well, Faith Beyond here, Effie. Yeah, Faith Beyond is probably one of the most decorated Dota 2 players that isn't talked about as often as all the others, but he has just been so consistently good at the game, and his performance on Wings during TI6, during their run, was so impressive. I mean, we just got a little throwback with that last game of the Taste of That Axe. He really, really did. And of course, he's still playing with, well, he is again playing with his former Wings teammate, Y, also TI winner. And they are coached by a TI winner. They got a lot of stacks on their side of the stage here, that's for sure. And with Faith Beyond also potentially bowing out of the competitive scene, Jenkins, it is very good to see him still crushing it. Yeah, I mean, I feel like you can feel for Matumba and Faith Beyond that they truly do believe it to be their last TI, because there's just this, like, aura of, no, not this time. You're not 2-0ing me right now. Like, especially with that last game on the Axe, he's like, guys, I got this. This is not my last game of TI. Yeah, if I had to choose one player out of every player, and it's like, who do you want to play with? Who do you put a lot of trust in to carry the game? It'd probably be Faith Beyond, because he's been like, I don't remember last time this guy had a bad game. You know, maybe they lost a couple of games, but he always delivers. Are you saying you got faith? Yes. In Faith Beyond. I really thought you were gonna make like an extra. No, I was waiting for it. I can't do it every single time. I know. Gotta keep you questioning. This one was too easy, I guess, as well. You know, that's yeah. But it would really be sad to see Faith Beyond walk off that stage today as a loser. I know we can't show any bias, but it's so hard to not root for these teams with these kinds of stories. Obviously, when you hear that a player is going to retire, suddenly everything changes. Yeah, this could be his last game ever. Yeah. We get to see. So it's like, just crazy. Give us at least one more. But Beast Coast, on the flip side, they don't look like they're retiring. No, they want to beat what they did last year. That's what they want. At the very least. Well, they already beat what they did last year. Last year they came last. Or they want to beat their record. They want to beat their record. Sorry. They want at least coming back and doing this well. I'm sure, you know, if they did get knocked out here, they're not going to feel too bad about it. But it would feel really good for them to have. Imagine having 2 South American teams in top 6. We're talking about how 1 in the top 6 is unprecedented. How about 2? That's insane. I also think that there is a little bit of pride. Of course, Thunder Awaken being top 6 is insane. It's really good. Beast Coast, I think, is like, gosh darn it, should have been us. They're like the we older gotta brother. Be at least the same. There's a little bit of pride. The younger brother that wants to compete with the older one. Yeah. Yeah, it's like, wait a minute, shouldn't we be the ones over there? How did they just usurp us so quickly? Yeah. But I mean, honestly, regardless of the outcome, I think Beast Coast in general are happy with what they got. If you can do better than last year, every single year, or at least just have the results that you want, then you're on the right track, especially when you have players their age who are still well into their competitive careers. They don't want to drop out anytime soon. So there's a really, really bright and big future ahead of them, whereas for PSG.LGD, this may very likely be the last year for not 1 but 2 players. I know that there were some rumors as well about Ame potentially taking a break after this TI. Yeah, that would be definitely a sad story, because, you know, coming into the previous TI, everyone did have them as their favorites, so that probably people expecting them as well this year. They do indeed. Let's find out what's going to happen. It's 3rd game time. It is drafting time. PSG.LGD versus Beast Coast. Game 3. PSG.LGD's turn to ban. A lot of lessons learned in this series so far already. The biggest one of previous game must be the Axe last pick. Be prepared for it better. Maybe take it out beforehand. We already know about the visit to the Undying from first game. The question is, where do these 2 most versatile teams take the draft this time around? In terms of bans, it's going to be the same as previous, and that means that the Tiny is still in the pool if PSG.LGD wants to pick it up. This time around, Marcy will be first pick for Beast Coast, and they'll take it first. And actually, we got Sven Leshrek as an opening. Lacoste, are you liking this? Yeah, I feel like Sven has been, Sven plus either Lich
has been a good response to this Marcy pick, where you like don't die, because Hero does a ton of magical damage and also a lot of physical, so being able to protect yourself not getting bursted with the Warcry. And we've seen this position 5 Sven work extremely well, because you're one of the, like, I'd say greedier 5, something that we haven't seen as much prior to TI, but you have a stun, relatively long duration stun, and also you deal damage. You don't necessarily need to get your ulti. Usually the build is 404, but still having someone in the front line to soak up a lot of your damage and potentially having another stun after that is more than you should expect from your position 5. This Batrider pick is courageous. I have to say, this hero has not had a good showing throughout TI. His win rate is much slower than you would expect a hero like Batrider, and the only hero that you see right now that you do well against is this support Sven, and maybe that's the idea with it, right? You go on him, you isolate him, you lasso him away, because the way that these Svens are played, interestingly enough, it's kind of opposite of what you would think, right? Because you look at Sven, he's this big tanky melee hero. You would expect him to go in first and die, but that's not how the hero works. For this 5 Sven to be useful, he has to stay alive for as long as possible, because the way that he's played, they rush shard and they stand around, they try to stand behind the carry and just give him that armor aura for as long as possible throughout the fight, try to buff up his teammates. If he dies, that aura is just gone. So I guess something like a Batrider would be really good in trying to take out the Sven, but I'm still really concerned because I think Leshrac is pretty solid against this hero, and Batrider in general got super nerfed recently. I like Bat with Marcy because I feel like it takes what you guys were saying about Marcy typically being a hero that we're gonna have a lot of physical damage, you know, even from the Marcy, from the hero that you're buffing up with the sidekick. Instead, this is flipping it and being like, they're going to play around the move speed that Marcy gives, the repositioning that Marcy gives, and enabling a Batrider who does purely magical damage, which is, of course, going to counter the Sven. And I think one thing with Bat versus Lesh is that Bat is pretty good at taking these long fights and kiting Lesh for long enough that even with the Bloodstone, if you get like 3 or 4 napalm stacks on the Lesh and you lasso him, he can die. It's one of the few heroes that can actually burst the Leshrac through the Bloodstone. With that being said, I feel like LGD, their response to this will be very likely to pick up some sort of ability to purge the sticky napalm, which is precisely why Beast Coast banned out the Oracle and the Lifestealer, who can self-purge it, of course. And also having 2 displacement abilities with Batrider and Marcy. Like, Leshrac does give you tempo, but sieging the high ground, the tier 3 tower, you gotta be very careful. And there's another Dispel hero, the Slark. So, I mean, Sven Leshrac, like this opener, this goes way back to like 648B. We go back in time like 15, 16 years ago. And it's just a lot of stuns. Yeah, stuns is good. I've been told when the enemy is stunned, they cannot play Dota. AKA, you're always better than them. They are good, but you know what's looking better than stuns recently? Armor and auras. They got both, though, with the armor with the Sven. So, for sure. Yeah, for sure. But like I mentioned, Batrider as a hero has really fallen off. I hope that I'm proven wrong, but overall, I feel like you have to accommodate for so much within your draft to enable a Batrider, right? You need heroes that he can play with early on. You need heroes that can potentially stack the triangle for him, because he isn't the type of hero who can go do it by himself for the first 6 minutes. He's a bit too slow. In the first game, Sven came out. when they had the Leshrac, IO was banned out, so this time around Beast Coast did ban out pretty much everything with the all the bad counters, and 10 seconds I feel like this Batrider is just going to be on the off lane, judging by the bans, because on the mid lane against Leshrac, it might be difficult. Batrider at the early levels, they want to get the advantage, like they want to dive you when they get like level 4, level 5, but Leshrac, if they put 1 or 2 points in Edict, you soak up that damage underneath the tower. Leshrac can trade, so I think it's just going to be on the off lane. Yeah. So I like this ET conceptually because natural order counteracts what
PSG are going for here with their damage reduction, their mitigation, their armor from Sven, and it's going to amplify both the damage coming out from Marcy and whichever unit she buffs and the Batrider. So it's very cool. Haven't seen it that often. The ET did come out a couple of times during group stages, but haven't seen it often enough in practice to assess like its strength in a game 3, an elimination game. But for the most part, on paper, it looks pretty good. I believe it's the first one on the main stage. Is it the first one? ET? Really? Maybe first or second. I know it's the first IO on the main stage. It's definitely good against the IO. You can drop the Earth Splitter whenever the reload comes in. Leshrac tends to like engage and just stay in there, and so you can easily Earth Splitter him or stomp and disengage, which is pretty nice. And I feel like this is setting up for a Lina pick to counter the Lesh, pure damage, magic damage to go through the Sven armor. Very good with Marcy rotating. It's a Chris Luck specialty. You can also give Spirit Vision for the Batrider to potentially get these lassos on the supports that we talked about are so important. The Sven and the IO definitely need to be isolated. But I like the point you make about the Earth Splitter on top of a relocate. That is a kind of a way to pseudo counter it. CK into Lesh Sven. Two heroes that traditionally counter the Chaos Knight. That's interesting. Very confident in this pick. What are the thoughts behind that, you think? It's one of the Hector's better heroes. Maybe that's why. But also being able to sleep maybe with Elder Titan and also displace them with either Batrider or Marcy, isolate the target with the CK's overwhelming damage. Maybe that's gonna be it. But looking at IO plus Leshrac and the Bloodstone, healing is gonna be through the roof. None of these heroes inside of Beast Coast do build into Spirit Vessel. Like you're not gonna get the item, so this is gonna be a huge issue. Yeah, I think the idea of the CK, because it's kind of bad when you look at it core to core and just what they have going for them, because CK is going to get really annoyed by the Sven armor, the aura, the items that they're going to build, and it's definitely bad versus the Leshrac, especially as Leshrac gets more items. But when you pick a CK, usually, especially into bad matchups, it means that you want a carry that can sustain and sit on a lane by itself for a long while, right? A carry that if the support leaves and goes on to play the opposite side of the map with the Batrider, with the Marcy, to kind of open up the map in another place, CK is one of the better heroes at just sitting on a lane by itself and farming or going into the jungle and farming. So it kind of opens up the rest of the team to have a better game. If they want to, like they could still play Sven as carry 5 seconds remaining against CK. Like this is the traditional matchup, I would say. And they did play IO Sven against Boom Esports. It's not that great in lane against the Batrider, so they might get a different hero, but still possibility. Like I think not necessarily good for the lane, but good for the game. I think with the bat nerfs, it is actually decent in lane. Just the constant stick charges from IO and this move speed from Sven, it's kind of like you cleave out the wave and then you regen up, and it's like you don't really even play the lane versus bat, you just farm. I personally don't think that they're going to play it as carry. They definitely did during group stage, but I think it's before Sven kind of evolved over the group stage and became the support hero that he is now. But they did do it, and they did do it to success, I believe. We didn't talk about this Brewmaster at all, actually. This is a pretty solid pickup against the CK. Yeah, clear the illusions. You can also purge the Batrider, napalms. You can throw the bat up into the air. You can purge the Marcy sidekick. There's a lot that the Brew does. There's not really anything that the Brew is not going to be able to get his ult off. Like CK stun, you can kind of see that he's coming in for it, and it's a long projectile. Marcy jump, Batrider lasso. Like all of these things need time to get on top of you, and Brew can just ult easily. But also something that I like that this Brew does is because you have to go on the Brew, or you have to try to kill him before the split. Usually to win these like fights later on in the game, but there are so many targets that you as a Batrider have to choose from to lasso. You either have to expend your lasso on this Brewmaster, or just he gets that ult off and it's chaos, or you have to expend your lasso on the IO, or whichever core that he's healing is going to sustain through the entire fight, or you can try to isolate the Leshrac, but if you do that, then IO's probably just going to reload him out. I mean, it's really annoying to be a single target team versus so many targets that you have to prioritize. Yeah. There's still an SF in the pool, unless I'm mistaken. No, you're not mistaken. Okay. And there it is. It's taken by Beast Coast, so we have a little bit maybe of a different type of lanes is what we're expecting, or CK offlane. You already wanted to see that. Or is it bat offlane? Things open because all 3 cores from Beast Coast can go to 2 lanes
I think with Beast Coast, though, you kind of know where these heroes are going. Yeah, it's a CK played by K1, and Shadowfiend, and the Batrider on the offlane. Yeah, if they don't, it's going to be the craziest flex that Beast Coast has ever done. Like, I would not expect that. Oh, there it is! Oh my goodness. The big boy himself. Oh yeah. I thought he was gonna stay sitting, and is like, oh, I'm gonna play this Spirit Breaker right now. Wait, so it actually is on my Sven Xingqiu Spirit Breaker. It's a core Sven. Yeah, I mean, that's why I mentioned it, because they do have this option. Sven does work well against the CK. It's considered like a counter, but as I said, not necessarily play it for the lane. Instead, pick it for the mid and late game timing. But Beast Coast, they do have all their signature heroes, so I like what PSG.LGD's got. I like the global presence with Io. I like the timing. Io Lash is an insanely strong combo, and having this like Spirit Breaker charge in. And a good Brewmaster game as well. Yeah. I liked LGD's draft a little bit more before it became a core Sven, but I can see what it can give them here for sure. It can also give them that nice BKB timing where they can just take that Roche with the God Strength and take over the triangle. I think Beast Coast can definitely fight back into this, even though they have a little bit of bad matchups on paper. They definitely have tempo, right? If they split up the map in two, have the CK just farm and just try to run them over with the Batrider, it could work out for them. But I have no idea what's going to happen. I think Beast Coast has to play for pickoffs because of the one-to-one counters, and I think Io's the best hero in the game at playing the map like that. So I would say I favor LGD in this. I also think Sven Io will beat a Batrider in lane. All right, we're gonna find out. Elimination on the line here. Let's head over to Slacks with Zhao8 for some final words. Absolutely. Another monumental moment here at the arena. Thank you again, Jin and Zhao8, for coming out over. Another game 3, another international, everything on the line yet again. I could ask you about the draft, I could ask you about the team, but honestly, I just want to know how you're feeling about Beast Coast. Any words for them, and any words for everybody watching you at home? 老王，就是我们又来到这里了，又是一届 TI， 又是一个回家局的第3把，然后。这边 BP 说实话也不太重要了，就想问你这边对 BC 有什么目前有什么看法啊？认为他们是什么样一个战队？包括有什么支持给所有的粉丝们？我觉得 BC 也是一个特别强的战队，现在南美 Dota 都实力特别强劲，我们也非常重视和尊重他们，所以这一把不管怎样，希望双方都能打出精彩的比赛。We think that Beast Coast is a really, really strong team, especially the entire South American region is now really, really strong, and we deeply respect them as well. So we think that this is going to be a very exciting match. All right, well, it absolutely will be. Ladies and gentlemen, let's go in to this fantastic match as we throw it over for our casters for Game 3. Thank you so much. Indeed, Slacks and Zhao8, the wonderful interview as always, showing some respect to the team that they're up against here in this Game 3. They pushed them to the limit. We'll see if they have enough left in the tank here to take the victory in the end. Trent, Gunnar, we got to see some kind of wild drafts. The switch up at the end there is Hector's trying to zone out Xingqiu, but the Sven now pushed to position 1. There was some thought it was going to be support. What do you think about the drafts? That's the power of Sven right now, right? We know that he's obviously helping to enable a lot of different cores right now. Everyone's looking towards this war cry, trying to help them stabilize in their game. This, in particular, the Shadowfiend, of course, throughout most of the group stage and then into the main stage where that hero's been struggling. But this idea of being there with the flash track, it all looks good, and I really like the picks. I like the CK when it came out, but then this Brewmaster, I think, really started to turn things for me in terms of really liking LGD's draft. I think this tournament right now is kind of the tournament of the melee position 4s. Spirit Breaker picked up now. It was really successful win. Alrighty, आ चुके हम हमारे first best of 3 के आखिरी मैच के तरफ. Elimination is on the line and survival at the same time. और this is Beast Coast versus PSG.LGD. काफी interesting matchup रहने वाला है और interesting drafts भी हुए हैं. I think PSG.LGD likewise, you know, जब सब कुछ दाव पे लगी हो, they will never risk with their life, and same even goes for Beast Coast. And जब मेरे darling Kratu यहाँ पे वापस आएंगे, वो खुश हो जाएंगे कि Whisper ने अपना comfort pick Batrider उठाया है. हमें अभी भी याद है जब उन्होंने Batrider उठाया था,
किस तरीके से अच्छों की छक्के छुड़ा दिए थे। सो होपिंग इस बार भी शुरुआत काफ़ी बेहतरीन हुई है उनको, फर्स्ट ब्लड भी मिल चुका है। बट PSG.LGD जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत ही एक ऐसा ड्राफ्ट है जहाँ पे चारों तरफ घूम घूम के खेलना पसंद करेंगे। फिलहाल के लिए अगर बात करें, दिस इज कैरी स्वेन हमने काफ़ी टाइम तक नहीं देखा, आयो के साथ आए हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग कैरी एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेयरिंग अगर आप बोले जाए, क्योंकि बोलें बिकॉज वी नो एक पॉइंट आता है, लेन प्रेजेंस भी एक नंबर रहता है, लेन पे उनको थोड़ा सा फर्स्ट इनिशियली बेबी सेट करना पड़ता है स्वेन को। बट इट ऑल कम्स डाउन टू विस्पर कितने जल्दी अपने कोर आइटम्स लाते हैं, जल्दी से जल्दी अपना ब्लिंक ले आएँ, बीके भी ख़त्म हो जाए, एंड देन वी कैन सी हिम मेकिंग ऑल दोस क्रेजी मूव्स। बट फिलहाल के लिए अभी जिस तरीके से ये लेन चल रहा है, an SF mid lane and a Leshrac mid, so हमने आई थिंक इस TI में लगभग 60 to 70% गेम्स में तो लेशरैक पिक होते हुए देखा है, बिकॉज ऑफ हाउ गुड दैट हीरो कैन बी। थोड़ा सा टैंक करवा दो, अगर सस्टेन कर जाता है तो सबकी जान ले लेता है। फिलहाल के लिए अगर बॉट लेन CSing की बात करें, आई गेस CK इज डूइंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ एंड Zinkyu, हमने इनको काफ़ी सारे अलग अलग सपोर्ट्स के साथ देख चुके हैं, बट इस बार वी आर वॉचिंग हिम प्ले स्पिरिट ब्रेकर गोजीरा। इट्स गोना बी रियली इंपॉर्टेंट मार्सी गेम। इनको चढ़ के अगर किसी तरीके से आयो को अपने खेमे में लेके आ जाते हैं, कुड बी अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट यहाँ पे स्टॉर्म हैमर का इस्तेमाल, बट वापस से गोजीरा का काफ़ी ज़्यादा डैमेज अलॉन्ग विद दैट फ्लेम कमिंग आउट, और आयो के होते हुए भी क्राटियस स्वेन ना बच पाए, और फिर से बैट राइडर को हो चुकी एक बेहतरीन शुरुआत। दूसरा किल भी मिल चुका है, अब वापस आराम से। ये क्या कर रहे हैं, क्या ये बचेंगे? He was not expecting that, but यहाँ पे जब तक टेथर्ड है उसके साथ साथ you know the deal, एक और फिजिकल अटैक will be enough, and वॉल क्राई की वजह से कोशिश कर रहे हैं and he got that kill। अगर यहाँ पे मर्सी भी चले गए ना, then it will be a big upset। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि स्वेन की जो किल आई थी उसके वजह से आप बड़े अचंभित थे, बट स्वेन वापस आए विराट कोहली की तरह, और उन्होंने अपना भाला उठाकर दही उठा के पटका यहाँ पर। एंड PSG ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट, उन्होंने ऑलमोस्ट 1000 गोल नेटवर्थ ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। उसके बाद गेम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा एंड इट विल बी अ ग्रेट थिंग टू वॉच। बट मिड पे देखिए ये क्या ही चल रहा है, यहाँ पर 3 प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए उन्होंने स्टन लगाने की कोशिश की एंड ही इज इन डेंजर, बिकॉज उन्होंने सबसे पहले लाइटिंग स्टॉर्म खाया, अर्स्प्लिट खाया, उसके बाद टावर के नीचे अगर आप आते हो, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे स्वागत होने वाला है। 4-5 मिनट हुए हैं, 5 मिनट के अंदर आई डोंट थिंक कि किसी भी प्लेयर की इतनी क्षमता, इतनी औकात, इतनी हैसियत होती है कि वो टावर का डैमेज टैंक कर सके। थैंक यू सो मच फॉर दिस एनर्जी ड्रिंक मेरे भाई फिक्सेस। अरे हम आए हैं तो एनर्जी की जो भौमार पूरे गुड़गांव में आ चुकी है। फिलहाल के लिए आई थिंक शुरुआत बीस्ट कोस्ट की काफ़ी बेहतरीन हुई थी, बट ये गोजीरा के साथ क्या हो गया, सडनली वहाँ पे टॉप लेन पे एलिमिनेट हुए, चले गए मिड लेन, वहाँ पे भी एलिमिनेट हो चुके हैं। और जो अच्छी खासी लीड, जो अच्छी खासी बढ़त यहाँ पे बैट राइडर बना रहे थे, स्वेन की जान खा रहे थे, मुझे लगा वहाँ पे उनको वो किल नहीं देना चाहिए। आई मीन वहाँ से वो कुछ भी करके आराम से निकल ही सकते थे, वो आगे रहे, उनको चाहिए था विस का वो किल, और उनको एक भारी कहीं ना कहीं एक जो पेनल्टी लगती है ना, जैसे स्वेन अटैक करे लग नहीं रहा था कि बैट चला रहे हैं वो तो बैट चला रहे हैं, मतलब वो ऐसे हथौड़ा भी रहता है उनके जो ना स्वॉर्ड के एंड पे ऐसे ऐसे सेट्स हैं। बट अभी मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जो स्वेन है, स्वेन थोड़ा सा ग्रीडी स्किल बिल्ड करे। स्वेन ने यहाँ पर क्लीव को मैक्स कर रखा है, और यहाँ पर विस्पर वांट टू टेक डाउन दिस आयो, बट आयो को माना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि टेथर का एक जो रूल होता है आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस काफ़ी कम समय में कवर हो जाता है। बट यहाँ पर नपाम और फायरफ्लाई यूज़ कर सारा अपना माना डिप्लीट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर विस्पर। और एक और बड़ा थ्रेट है जो PSG के लिए यहाँ पर प्रूव हो सकता है, दैट इज़ केओस नाइट। ये राजा नाइट जो नाइट किंग है, ये केओस मचा देता है, बिकॉज डैमेज है। कल हमने देखा था स्केटर ने कितना बढ़िया सीके खेल के दिखाया था, जहाँ पर उन्होंने मतलब सबको हैरान कर दिया था। यहाँ पर रेस करने की कोशिश, यहाँ पर Zinkyu जो अभी भारत हम खेल रहे हैं, उनकी HP कितनी ज़्यादा कम है, और ये स्टन मारने की कोशिश, स्टन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। एट द फाइनल रेस स्माइल गॉट दैट किल विद अमेजिंग
यू नो स्किल्स। और गोजिरा बैक टू बैक रोटेशन कर रहे हैं लेवल के अंदर, ऑफ कोर्स यहाँ पर उनको थोड़ी परेशानी होगी। और उनकी आइटम प्रोग्रेशन देखिए, उनके पास लिटरली एक ऑर्ब ऑफ वेनम है जो हम इंडियन प्लेयर्स कहते हैं नींबू मिर्ची, साथ साथ उनके पास एक आयरन रूट ब्रांच या एक मैजिक वॉन्टेज जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। थोड़ा सा उनको लेन पे फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा आइटम पे करना चाहिए, बिकॉज अभी उनके पास 1000 गोल्ड का नेटवर्थ नहीं है। ही इज अबाउट टू टच इट नाउ इन एनी सेकेंड। और ब्रू मास्टर वर्सेस सीके की फाइट के अंदर कुछ भी हो सकता है, बिकॉज जो हमारे स्पिरिट ब्रेकर है ही इज अबाउट टू चार्ज, और 3 प्लेयर यहाँ पर आ चुके हैं। और ये देखिए उतनी देर के अंदर ये जो मौत को कहते हैं ना गले लगाने वाली बात है कि वो जा रहे थे सीके के लिए, बट कहते हैं कि यार तुम कैरी क्यों मारोगे, मेरी लास्ट से काम चला लो, मेरे से ही चला लो कि ओ कोरियर स्नाइप होने वाला है। बट चलिए बच तो गए अभी। कोरियर स्नाइप आपको क्या याद आया? मैथ्यू, द लेजेंड मैथ्यू। मतलब इन्होंने जो थंडर अवेकन के जो प्लेयर है मैथ्यू, उन्होंने कल क्या ही करा था भगवान जानता है। और मैंने घर जाकर कोशिश करी रेडिट में बहुत जगह ढूंढने की कि मैथ्यू का माइंडसेट देखा जाए, उनके मस्तिष्क में कैसे इरादे, क्या मंसूबे पनप रहे थे जो उन्होंने ऐसा स्टेप लिया। आधा घंटा उन्होंने बिताया वहाँ पर, और आखिरी में जब पकड़े गए थे तो टीपी करके भी भगने में सबसे बेहतरीन है वो। एक नंबर हर महीने में आप बोल सकते हो। बट फैंटास्म इस्तेमाल किया है क्या इधर इन्होंने? अभी तो यही तो एक डर था, क्योंकि आप देखिए जब भी आप आयो रहते हैं, आपके पास 12 रहते हैं, लेशरैक रहते हैं, you've got even ब्रूमास्टर, तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन दे विल हैव टू ट्राई टू शट डाउन इन लोगों को, क्योंकि इनका एक जो ग्लोबल प्रेजेंस जिसकी मैं काफ़ी बातचीत करता हूँ बहुत ज़्यादा है। एनी टाइम गैंग इनिशिएट कर सकते हैं, और इसके लिए एल्डर टाइटन को लेना एक अच्छा पिक है मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि सडनली अगर किसी के ऊपर आ रहे हैं उसको आप अगर ले लेते हो अपनी तरफ तो फ़ायदे में रहोगे। बट देखिए नथिंग टू से को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है, यहाँ पे शायद टेक डाउन हो भी सकते हैं। जी हाँ, उनको डाउन कर दिया गया है फिलहाल के लिए। बैट राइडर को वहाँ से किसी भी हाल में बच के जाना पड़ेगा। बट स्वेन भी इस फाइट के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे ओ बैकअप कमिंग फ्रॉम स्पाइल। इतनी जल्दी हम लोग को एक 5v5 फाइट्स देखने को मिल रही है, मजे आ रहे हैं। एंड 4 प्लेयर्स PSG.LGD ने ऐसे देखते ही गवा दिया, और सीके चुपचाप से फार्म कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा अपने आप को फाइट्स में ला नहीं रहे। हमको भी पता है अर्ली गेम सीके का वो डैमेज आउटपुट नहीं रहता। बट स्किटर की एक बैकलाइन स्टोरी जो हमें हमारे कल मित्रों ने बताई थी कि इनका जो अप्राइजल हुआ था, जो अगर MMR लीडर बोर्ड्स पे टॉप पे आ रहे थे, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सीके गेम प्ले। जब भी सीके लेते उनके वन ऑफ द मैक्सिमम विन रेट्स रहते थे सीके के साथ, एंड ही वाज दैट सीके वाज हिज कंफर्ट थिंग। बट आई डोंट नो इफ इट्स द सेम हियर विद K1, कि कल सीके का जलवा देखने को मिला था। सीके को रोकना कल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका था। ऑल यू नीड टू डू इज सर्वाइव एंड सस्टेन। बट कैसे करोगे जब 3 प्लेयर्स स्क्रैट आपके ऊपर चढ़ रहे हैं, भाग के पीछे चल। काफ़ी कम HP के अंदर उन्होंने अपने आप को यहाँ पे बचाया है। बट क्या ये घर जाएंगे या क्रीप मारकर अपने आप को हील अप करके गेम के अंदर वापस लाएंगे? बट नेटवर्थ की अगर बात करें, सबसे ऊपर है यहाँ पे शैरोफीन, जिनके पास ऑलमोस्ट 4600 है। उनका जस्ट साथ दे रहे हैं यहाँ पर ऑफलेन विस्पर, और उसके बाद बाकी के डायर प्लेयर है। ये कोई अच्छी खबर नहीं है, बट धीरे धीरे जो डायर प्लेयर है वो भी इस गेम के अंदर एक बरकरार अच्छी कोशिश करे। बट मार्सी ने यहाँ पर उनके मुखड़े के सामने टावर को डिनाई किया एंड वेंट बैक टू द सेफ्टी। गोजिरा के पास अभी एक ब्लेड्स ऑफ अटैक, बूट्स ऑफ स्पीड एंड कुछ बेसिक स्टार्टिंग गेम आइटम्स है। और ये बॉटर की है या नहीं, उन्होंने सीधा रीजन को एक्टिवेट करा है। दिस रीजन वाज हाईली रिक्वायर्ड बाय एल्डर टाइटन और सीके। इनके पास काफ़ी ज़्यादा कम HP है, बट यहाँ पर हो गया है SF पर कमिटमेंट। अगर अर्थ स्प्लिट कनेक्ट हो गया देन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। बट अभी भी SF बरकरार टिके हुए हैं, 50-60% HP उनके पास। बट ये डिस्पोज किया, जिंक्यू को करा पीछे फेंका, और इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एनफ। बिकॉज फायरफ्लाई एंड नपाम का जो कॉम्बो होता है इंसान को गला देता है अंदर से। और जो हमने देखा वही हुआ, जो इनिशिएशन था PSG का, इट वाज नॉट वेल ऑर्गेनाइज। एक वेल एग्जीक्यूटेड अगर गैंग होता तो शायद से हमें कुछ और देखने को मिलता। बट स्वेन, यूजली स्वेन को अटैक स्पीड की जरूरत होती है, बट आई थिंक जस्ट बिकॉज हैविंग आयो इन योर बैक, आपको उस फेज बूट को बनाना सही लगा मुझे। प्लस आपको एक चेजिंग पावर भी मिल जाती है। साथ साथ उन्होंने बनाया MOM। अगला आइटम मे बी आप ब्लिंक या तो इको सेवर हो सकता है, बिकॉज डैमेज आइटम की इतनी खास जरूरत होती है। मे बी क्रिट्स की हो सकती है। अब तो डेडलेस के सिवाय आप सिल्वर एज भी ले सकते हो, जैसे गायब भी हो जाते हो, आपको क्रिट्स भी एनेबल हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आप उससे कर सकते हैं। सो क्रैट, मेरा आपसे एक सवाल रहने वाला है, क्योंकि मैं भी थोड़ा
चिंता में हूँ कि ये जो SF इन्होंने लिया है, आई थिंक आई एम एंटिसिपेटिंग ये थोड़ा सा यूटिलिटी वाला SF खेलेंगे जो एग्स वगैरह जाएंगे, बिकॉज यू हैव द, हाँ मिक्की ने जो खेला था, क्योंकि एल्डर टाइटन है उनके साथ, अगर लेशरैक को गलती से भी वहाँ पे अपने वो स्पिरिट के साथ पकड़ लेते हैं और वहाँ पे वो फटते हैं, तो मतलब लेशरैक तो खत्म है। यहाँ पर जो ऑफलेनर है विस्पर पिक्सेस, वो है बैट राइडर। बैट राइडर क्या होता है? बैट राइडर एक इनिशिएटर है या तो काउंटर इनिशिएटर है। अगर यहाँ पर PSG की तरफ से कोई अंदर घुसता है देन उसको लासो करके घर लाना, ये यहाँ पे बैट राइडर का काम है। या तो गैंग की शुरुआत के अंदर आप बैट राइडर से किसी को ला सकते हो। आई थिंक द आइडियल टारगेट तो लेशरैक ही रहेंगे, मतलब लेशरैक अच्छा हो सकता है, लेशरैक और ब्रू मास्टर, बिकॉज ब्रू मास्टर की औकात, ब्रू मास्टर की शहन, वो कहते हैं ना जो उनका पोटेंशियल है, जो कैपेसिटी है, वो तभी दिखती है जब वो आर बटन दबता है। बट यहाँ पे एक अच्छा गैंग देखने को मिल सकता है। और ये हुई ना बात बहुत जल्दी गोजीरा एंड यहाँ पर जो हमारे विस्पर है उन दोनों ने मिलकर एक अच्छी जुगलबंदी दिखाई और नथिंग टू से को, मतलब कुछ सेकेंड ही लगे और उनको गेम से कर दिया बाहर। स्टॉर्म फार का थोड़ा होल्ड बैक करने की कोशिश, फेथ बियान काफी जरूरियत कहे ना, काफी जरूरी गेम प्ले यहाँ पर दिखाते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज लास्ट गेम तो इट वाज ऑल चेंडॉल शो बाय हिम, बट इस गेम के अंदर एवरीवन हैज टू स्टेप अप, बिकॉज लास्ट गेम फेथ बियान ने मोमेंटम को कैरी किया, फ्लैग बियरर की तरह आगे बढ़कर खेले, बट अब मौका है आमे एंड नथिंग टू से को थोड़ा सा एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ पे बैक करने का, बिकॉज अब 20 को भी काफ़ी लाजवाब गेम का प्रदर्शन कर रही है फिक्सेस। आई थिंक यहाँ पे नेक्स्ट जो फोकस रहेगा 20 कोर्स का ये होने वाला है कि अपने कोर आइटम्स BKBs एंड ब्लिंक्स तो एटलीस्ट ले आएँ और उसके बाद और ज़्यादा फाइट्स के अंदर इंगेज इन कर सकते हैं। एंड ये एग्जैक्टली विस्पर यही कर रहे हैं अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो पे, व्हेन दे नो कि PSG.LGD के अगेंस्ट खेल रहे हो तो गो विद द हीरोज दैट यू आर बेस्ट विद। और आई थिंक ये जो एल्डर टाइटन का पिकअप है फ्रॉम बीस्को साइड, आई रियली लाइक इट, स्पेशली कितना अच्छा ड्राफ्ट को सूट कर रहा है। आपकी सारी इनिशिएशन खत्म कर देता है। ऑल ही हैज टू डू कि पीछे बैठ के रहें, और अगर कोई भी आपके कोर के ऊपर चढ़ रहा है, एक स्टन लगा फिर शैडो फील्ड अपना जलवा दिखा देंगे, या फिर बैट राइडर घुस के उनके पास मल्टीपल एवेन्यूज मिल जाएंगे किसको पिक करना है, कैसे पिक करना है, और उसके बीच अगर सीख के चले गए तो आपको ही पता है क्या शामत आने वाली है। एंड अगेन हैविंग मार्सी बाय योर साइड, इतना ज़्यादा आपको हेल्प भी मिलता है। बट एक चीज़ है, PSG.LGD की टावर टेकिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली द डैमेज कमिंग आउट ऑफ स्वेन, क्लिफ भी है, तो लेट गेम पे दे हैव सम आंसर्स फॉर द CK ऑल्सो। ऐसा नहीं कि CK के लिए कोई आंसर नहीं है इनके पास। नो नो नो, वहाँ पे स्वेन है, स्वेन का क्लीव विल बी इनफ टू टेक डाउन द CK। बट अभी अच्छी बात क्या लग रही है कि इवन स्वेन रिक्वायर्स सम आइटम। 14 मिनट में अगर स्वेन गॉड स्ट्रेंथ, MOM, इको सेबर और ओवरचार्ज लेकर घूमेगा देन यू हैव टू बी स्कैर्ड। बट वहीं पे CK का भी आमलेट कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब दैट स्ट्रेंथ गेन, दैट अटैक स्पीड, दैट डैमेज गेम is little extra. But Leshrac को देखिए, is felt so behind and it gets very difficult to recover farm, especially जब बीस कोर्स के प्लेयर्स इतना अच्छा खेल रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक वो यहाँ पे रूम देना ही चाहेंगे PSG.LGD को। नथिंग टू से 2 या 3 बार ऐसे पिक ऑफ हुए हैं ऐसे सिचुएशंस पे। एंड अब देखिए फिर से इनिशिएशन आता हुआ, मार्सी ऑलरेडी घुस चुके हैं, डिस्पोज करने का प्रयास रहने वाला है। आयो को टैंक करना पड़ा वो पूरा रिक्विम ऑफ सोल्स, और इसी के साथ फेथ बियान भी अपने स्पिरिट फॉर्म पे आ चुके हैं। यहाँ पे भारी डैमेज होता है, CK को इन्होंने फिगर आउट कर दिया और उनको मार दिया। और सेम टाइम पे मार्सी अपने दोस्तों से काफ़ी दूर अकेले ही डायर जंगल में सूली पर चढ़ जाती हुई, तो PSG.LGD के लिए एक बहुत ही शानदार जीत, और ये नथिंग टू से के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है ऑन दैट कमबैक एज ही इज जस्ट मेल्टिंग डाउन द एल्डर टाइटन। और PSG.LGD जी हाँ, मतलब ये गैंक हार के जो इन्होंने अच्छी खासी लीड बनाई थी सारा गवा दिया। अब यहाँ पर एक बार यूल सेप्टर कॉम्बो लगने लग जाता है लेशरैक का, कॉज जैसे आप ज़मीन पर अपने पाँव टिकते हैं आपका स्वागत होता है स्प्लिट के साथ, और प्लस यहाँ पर पल्स नोवा और डायबोलिक एरिक का इतना ज़्यादा बर्स्ट डैमेज होता है कि लेशरैक आपको मौका तक नहीं देगा। अब यहाँ पे पड़ा अर्थ स्प्लिट, उसके बाद आपको डायबोलिक, सेम चीज़ जो थोड़ी देर पहले लेशरैक उसके साथ हुई थी एल्डर टाइटन के साथ, वही चीज़ विस्पर के साथ की गई। थोड़ा ओवर कमिटमेंट दिखाया यहाँ पर और थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड था यहाँ पर। नथिंग टू से अब रीलोकेट कर आयो अब एक अलग जगह पे ले गए हैं यहाँ पर अपने प्लेयर को, और अब देखते हैं कि क्योंकि वो मिड पे स्वेन अकेले बॉटम पे फार्म करे। आई थिंक इट्स अ स्वेन गेम, जिस तरीके से जिस स्पीड से यहाँ पे स्वेन फार्म कर रहे हैं ना, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक इट वाज ऑल डोमिनेंस इन द नेटवर्क बाय रेडिएंट्स।
इस छोटे से गैंग की वजह से स्वेन अब सबसे ऊपर है। स्वेन के पास एक क्लीव जैसी चीज है। हाँ जी, सबसे ऊपर SFN लाइक दे वर स्ट्रगलिंग, बट अब देखिए ना 500 गोल्ड का ऑलरेडी एडवांटेज बना गया है। अभी थोड़ी देर में एंशिएंट स्टैक होंगे। आपको भी पता है कि एंशिएंट कितनी जल्दी गलते हैं जब स्वेन अपना गॉड स्ट्रेंथ एंड हाई क्लीव के साथ उनको टेक डाउन करेंगे। फार्म के अंदर बूस्ट आएगा और जब एक हाईली फार्म स्वेन आप पे चढ़ता है देन एक चीज कंफर्म होती है, आपका पवेलियन वापस जाता है। एंड आई थिंक एक चीज़ मुझे लेशरैक का भी बहुत पसंद आया कि इन्होंने अर्ली यूल्स ऑफ सेप्टर के लिए ऑप्ट किया। मल्टीपल चीज़ों के लिए आप इनिशिएट भी कर सकते हो, आपके ऊपर इनिशिएशन होता है तो आप एटलीस्ट अपने आप को बचा भी सकते हो। और यहाँ पे PSG.LGD को भी मौका मिल चुका है। एक 3-man स्मोक यहाँ पे सामने ब्रू मास्टर मौजूद है। उनके पास अभी तक उनका जो अल्टीमेट एबिलिटी नहीं आया है। He hasn't been able to shift it to that yet. But कुछ देर में आ जाएगा, 8 से 9 सेकंड। It's okay. But yes, they already started the party. Elder Titan it can be in danger. But ये देखिए जो डैमेज है यहाँ पर मार्सी बहुत लोगों के बीच में से जाने की कोशिश करी थी। One more attack will be enough to take down that मार्सी. But बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे डैमेज टेक डाउन करते हुए दिख रहे हैं। Because that is Spirit Breaker, that is Zinq. अब SF को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। But SF के पास है BKB और लेशरैक को सबसे पहले उन्होंने टेक डाउन किया मिड और क्लोज रेंज और कुछ फिजिकल फटकों के साथ। और यहाँ पर फ्लेम ब्रेकर आता है बट फ्लेम ब्रेकर से कुछ अलग सा अचीव नहीं कर पाए। बट Zinq, आयो एंड स्वेन दे मेड इट टू द सेफ एरिया। बट व्हाट्स दिस ट्रेड बैक, बिकॉज़ यहाँ पर यू गॉट अ पोजीशन 5 वर्सेस पोजीशन 2। यहाँ पर जो जीत है अल्टीमेट, अगर पूरा हिसाब लगाएं सारा फायदा को तो 20 को उसको एक अच्छा फायदा हुआ है। बट स्वेन यू नीड टू स्टॉप दिस गाय ASAP, बिकॉज इस प्लेयर के पास MOM है, ब्लिंक डैगर है, इको सेबर है और फेस बूट है। और अगर ये चीज़ नहीं रोकी देन काफ़ी परेशानी के अंदर हमारे जो 20 कोर्स के प्लेयर हैं वो आ जाएंगे। अभी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो अगर सोचिए क्रैट स्वेन पूरा फैट हो जाता है, उनके क्लीव्स में ही पूरी 20 कोर्स की टोली ख़त्म हो जाएगी ऐसे ही देखते देखते। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे फाइट इनिशिएट हो चुका है और ब्रू मास्टर काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में नज़र आते हुए स्पिरिट ब्रेकर चार्जिंग करेंगे SF के ऊपर। बट SF थोड़ा सा ऑन द रिट्रीट ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे स्वेन अलॉन्ग विद आयो। बहुत ही अच्छा स्लीप मैं कहूँगा एल्डर टाइटन की तरफ से देखने को मिला है और एक और बेहतरीन किल और इसी के साथ टीम वाइप। ओह माय गुडनेस क्रैट, ये क्या हो गया? They wanted to take down this SF, but they didn't realize कि इस SF को मारने के लिए they had to give a lot in, और वही हुआ। Because गेम के अंदर शुरुआत तभी सही होगी यहाँ पे PSG की तरफ से जब वो जाकर ब्रू मास्टर के अल्टीमेट से शुरुआत करेंगे। बट ब्रू मास्टर द फर्स्ट वन टू डाई, उसके बाद एक एक करके कहते हैं ना 1 by 1 डोटा का स्टाइल नहीं है। यू प्ले एज अ टीम, यू विन एज अ टीम, यू लूज एज अ टीम। और यहाँ पर दे गॉट बीटन एज अ टीम। बिकॉज आप ओवर कमिटमेंट की एक ही प्राइस है। देखो ब्रू मास्टर के पास यहाँ पे अल्टीमेट नहीं है। ही ट्राई टू गो इन, उन्होंने यहाँ पे ह्यूल चैप्टर किया और स्प्लिट मारा। उसके बाद यहाँ पे जो डैमेज है ना, देखिए शैडो विक्टिम की वजह से दोनों को फियर पड़ गया था। बट उतनी देर में रियलिटी ड्रिफ्ट आई, स्टन आया एंड ही वाज एलिमिनेटेड। एक बंदा डाउन है, अभी भी 4 प्लेयर बचे हैं। अभी देखिए एवरीवन वांटेड टू किल SF, एवरीबॉडी इज रनिंग टुवर्ड द SF। जो 3 प्लेयर हैं यहाँ पे SF की तरफ भाग रहे हैं। व्हाई देयर इज सो मच अटेंशन गिवन टू द SF, जबकि पता है कि बाकी 4 प्लेयर they are trying to stop them and like he's so he's confused. Why like you don't give me this importance? आपने देखा उनका आर्मर कैसे मेल्ट हुआ जब ET उनके बगल में थे और वो स्टन पड़ा। मतलब सब 2-2 शॉट्स के मेहमान हो गए थे और ओह गॉड दिस इज हॉरेंडस। एंड स्वेन वापस से समझ चुके हैं कि ये गेम अगर ऐसे चलता गया तो हाथों से उनके निकल जाने वाला है। एंड एट दिस पॉइंट आई मीन जिस तरीके से वहाँ पे ET ने बचाया अपने कोर को और उसके बाद जो टीम फाइट जीता है 20 कोर्स के प्लेयर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनकी तबीयत खराब है। और फिर से इनिशिएशन आता हुआ इस बार आयो पकड़े गए एंड दे विल डेफिनेटली नॉट वांट टू फाइट व्हेन आयो इज टेकन डाउन। बट जो मेन टारगेट है यहाँ पे उसको खींच के लाया जा रहा है और इसी के साथ SF की अल्टी भी देखने को मिलता हुआ। एक फेथ बियान काफ़ी मुश्किलों में फाइनली अपने अल्टीमेट एबिलिटी का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। लो HP पे थे ज़रूर और यहाँ पे डैमेज नहीं देना चाहेंगे और इंस्टेंट TP बैक करना चाहेंगे अपने बेस की तरफ। दे नो कि चलिए एक किल तो मिल चुका है, ट्रेड भी हो गया तो फ़ायदा नहीं है। बट कॉन्सोलेशन स्वरूप शायद
ये ईटी की जान जा सकती है। बिल्कुल जाएगी, यहाँ पर कोई मौका ही नहीं मिलेगा बिकॉज यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें सब मार दी गई हैं और दोनों सपोर्ट को मार गिरा है। अब जो एडवांटेज दी थी टीम वाइब लेके, वो एडवांटेज उनको 3000 गोल्ड के एडवांटेज दिलाकर गई थी, बट जो 2 सपोर्ट मरे और उसके बाद जो भी टाइम वेस्ट हुआ, जो फार्म गेन करा है यहाँ पर PSG ने, उसके जो एडवांटेज है वो 1000 गोल्ड कम हो चुकी है। और अब स्वेन इज बैक ऑन फार्मिंग और वहीं पे लेशरैक टॉप जंगल में फुल एंजॉय कर रहे हैं, सारे क्रीप लेन कर रहे हैं, साथ साथ लेन में भी जाकर लेन पुश करेंगे। बट CK ही इज अ फैट करेक्टर नाउ बिकॉज उनके पास BK भी है, इको सेवर है और साथ साथ आर्मलेट और पावर थ्रेड। द CK विल बी डीलिंग लॉट ऑफ डैमेज। द प्लेयर्स लाइक लेशरैक, आयो एंड स्पिरिट ब्रेकर विल बी इन लिटिल डेंजर। डू यू थिंक एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कोई प्लेयर हैल्बर्ट बनाने वाला है? बिल्कुल बनेगा हैल्बर्ट, जरूर, बिल्कुल 101% बनेगा बिकॉज 2 फिजिकल डैमेज हीरो लाइक SF एंड CK। दिस इज अ लिटिल ग्रीडी बिल्ड, ग्रीडी ड्राफ्ट किया गया है बीस कोच की तरफ से, एंड आई एम सरप्राइज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर द ड्राफ्ट। कुछ ना कुछ बैन करेंगे, कुछ ना कुछ पिक हो जाएगा, बट जो चीज़ आपके कंट्रोल में ये है कि आप उन प्लेयर्स को फार्म नहीं करने दे सकते। बट आई एम सरप्राइज कि PSG ने उन्हें फार्म करने दिया है। जी हाँ, PSG ने फार्म करने दिया है, बट एटलीस्ट चलिए एक राहत की सांस तो आगे। अब स्वेन थोड़ा और फाइट्स में टिक पाएंगे। और देखिए यहाँ पे पुश हो रहा है टॉप लेन इस वक्त, और डैमेज देने की कोशिश करेंगे। अभी भी मार्सी और एल्डर टाइटन बगल में छिपे हुए हैं। देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि PSG-LGD के कौन से प्लेयर्स यहाँ पे इसको कंटेस्ट करने आएंगे, क्योंकि ये टियर टावर 2 तो जा रहा है टॉप का। एंड जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो कतराएंगे ही PSG-LGD के प्लेयर्स। वाकिफ़ हैं इस बात से कि जो एजेस ऑफ इमॉर्टैलिटी है दैट इज़ ऑन SF, so as long as it's still there, fights force out तो नहीं करेंगे. But on the other side, what they're trying to do is try to push a little bit on the bottom side of the Radiant Tower. But यहाँ पे लासो से खींचने की कोशिश ज़रूर की थी, but वाई तो ऐसे ही धरे के धरे रह गए, और ये लेशरैक तो फ्री फूड है. एंड स्पेशली जब SF के पास डबल डैमेज रून आता है, हाउ इज ही गेटिंग इट? 2 गैंग्स ऐसे हो गए जहाँ पे उनके पास DD रून था और उन्होंने इसका बखूबी फायदा उठाया. 3-4 शॉट्स एंड लेशरैक इज तो डेड पीस ऑफ मीट. एंड यहाँ पे मौका ना भगवान सबको देता है, गेम सबको मौका देती है, बट डिपेंड्स कि आप उस मौके से फ़ायदा कैसे उठाते हैं. सो दिस SF इज मेकिंग श्योर कि एवरी टाइम कोई एक प्रोडक्टिव रून उनके हाथ में आता है, उस मौके का एक भरपूर फ़ायदा उठाते हैं. बीइंग एन मिड लेना, SF का जो फार्म स्पीड है, जो प्रेजेंस है, जो इनपुट है, जो इम्पैक्ट है इस गेम के अंदर, वो बहुत बेहतरीन रहा है, इम्पेकेबल रहा है. और जिस तरीके से वो खेल भी रहे हैं, थोड़ी देर अगर सेम चीज़ चलती रही देन PSG के सपने बहुत ज़्यादा खतरे में लग रहे हैं. बिकॉज गेम 2 के बाद आई वॉज नॉट होपिंग कि यहाँ पर इतना नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस वो दिखाने वाले. गुजरा ने एक नाइस जंप ऑफ करा, बट SF की HP काफ़ी ज़्यादा ब्लीड हो चुकी है. क्या वो यहाँ पर BKB चलाकर अपनी अल्टीमेट कमिट करना पसंद करेंगे? बट उनकी HP हद से ज़्यादा वीक, बट वहाँ पर देखिए एक एक करके बहुत सारे प्लेयर यहाँ पर जाने वाले हैं. बट CK इस वक्त गॉड स्ट्रेंथ वाले स्वेन के साथ 1v1 करने के लिए भरपूर तैयार है. एक स्टन हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, बट यहाँ पे फेथ, बियान एंड स्वेन दोनों एक साथ गोजीरा को मारना चाहते हैं. एंड आई डोंट नो व्हाट दे आर एग्जैक्टली ट्राइंग टू डू, बट जिंक्यू की HP देखिए ज़्यादा कितनी कम है. 3 पे यहाँ पे पिक ऑफ हो चुके हैं 20 कोच की तरफ से. एक यहाँ पर SF एंड मर्सी बचे हैं. एंड हम सरप्राइज कि CK को मारने के लिए कितना कुछ लगा है, उस टाइम पे उनको सपोर्ट क्यों नहीं मिला. नथिंग टू से, इस वक्त बहुत ज़्यादा पैसिव पोजीशन के अंदर है एंड ही शुड बी लिटिल केयरफुल. बट उतनी देर में उसको टेदर मिल चुका है आयो के साथ, एंड अब ये अकेला SF कब तक अपनी खैर मनाएगा. इसको मारा भी जाएगा, इसको रगड़ा भी जाएगा, इसको गेम से बाहर निकालने का पूरा बंदोबस्त भी किया जाएगा. और जो टीम वाइब अभी थोड़ी देर पहले PSG की हुई थी, अब हमें 5 प्लेयर पेविलियन की तरफ जाते हुए देखिए 20 कोर्स की तरफ से. क्या चल रहा है? दिस इज 2 and fro, कंप्लीट 2 and fro, पेंडुलम गेम पे चल रहा है. जी हाँ, पूरा का पूरा यहाँ पे पासा पलट चुका है, क्योंकि जो नेटवर्थ की लीड यहाँ पे बीस्ट कोस्ट के पास थी वो देखिए 5000 लगभग की हो चुकी थी. एक फाइट हारे, पूरा 5000 गया तो गया. PSG-LGD अब टॉप पे जाने वाली है, और CK ने काफ़ी अच्छा कवर तो कर लिया था, बट ये स्वेन के साथ CK का फाइट में एंगेजिंग करना. और वहाँ पे जिंक्यू की भी हैरानी वाली बात यह है कि जो स्पिरिट ब्रेकर रहते हो, चांसेस रहते हैं कि आपका बैश लगे, और 2 बार लग गया. एक बार तो अपने फर्स्ट किल लगा दिया उन्होंने, उसके बाद एक चाटा मारा, फिर से वहाँ पे CK रुक गए. तो CK नीड्स अ लिटिल बिट मोर फार्म. देखिए ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पे CK 1-2 प्रॉक्स और डाल देते तो शायद उनको थोड़ा सा ना लाइफ स्टिल मिल जाता. मे बी देयर वुड हैव बीन चांसेस, बट वो मौका ही नहीं मिला.
और प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ पोजीशन रह गए थे। थोड़ी बहुत इनिशिएशंस में गलती हो गई यहाँ पे बीस्कोस के प्लेयर्स के द्वारा, बट यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि अगर ये किल निकाल पाए तो थोड़ी बहुत राहत की सांस मिलेगी। जी हाँ, मिल भी चुका है, बट अब देखना यही रहेगा कि इनका जो नेक्स्ट आइटम क्या रहने वाला है, क्योंकि अभी तक लेशरैक इतने बड़े पोटेंशियल थ्रेट बने नहीं है, बट एट द सेम टाइम वी नो एट अ सर्टेन पॉइंट ही हैज़ टू गो फॉर अ बीकेबी। अब ये तो कंफर्म शॉट है कि जो ड्राफ्ट है ना इस वक्त फिजिकल है बीस्कोस के पास, बट यहाँ पर पीएसजी के पास एक बैलेंस ड्राफ्ट है। ब्रू मास्टर इज अ गुड इनिशिएटर, काउंटर इनिशिएटर है। वहीं पे लेशरैक की बात करें, ही इज़ अ पावर हाउस ऑफ मैजिक स्पेल्स। अगर यहाँ पे लेशरैक को फ्री टाइम मिला देन वो भी एक अनॉयंस फैक्टर के अंदर बहुत आगे निकल जाएंगे, बट द डैमेज तो आप बताइए फिर गॉड सेंट पे वी हैव स्वेन 2, पीएसजी हैव स्वेन 2। सो अगर ये गेम लेट जाता है, थोड़ी देर भी और जाता है और यही लीड रहती है, देन पीएसजी के चांसेस और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और बीस्कोस को बचने के लिए जितनी जल्दी हो दे हैव टू मेक श्योर कि अब वो और ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर सके, जितने भी टावर रहते जाए, मे बी लाइक हैव अ फाइट, ट्राई टू विन अ गैंग एंड गेट एटलीस्ट वन साइड ऑफ बैरक, जिससे उनकी गेम प्ले और उनकी नेटवर्क पे फायदा होगा। जिनकी दूसरी बार मरेंगे अगर यहाँ पे अभी मरते हैं। उन्होंने वॉर्ड लगाने की कोशिश तो करी है यहाँ पर और अब डिस्पोज करेंगे। एंड पिछले 1 मिनट में हमने जिंक्यू को 2 बार टॉप लेन में बढ़ते हुए देखा और SF एंड एवरीवन सपोर्टेड इन दिस होल ऑपरेशन। आई मीन धीरे धीरे छोटे छोटे पिक ऑफ्स मिल रहे हैं, बस इसी की खुशियां हैं बीस्ट कोस्ट के लिए, बट इससे सिर्फ काम नहीं बनने वाला, क्योंकि अगर स्वेन अभी भी नेक टू नेक चलेंगे केओस नाइट के साथ। आप मुझे बताइए क्रैट, आपने इतनी डोटा खेली, अगर एक प्रॉपर सिर्फ 1v1 होता है बिटवीन अ फुली फैट सीके एंड अ फुली फैट स्वेन, हु इज गोइंग टू विन दैट वन? It is going to be close, but I feel like it can be Sven just because of God Strength and War Cry. Because हर दोनों प्लेयर के आइटम के अंदर असॉल्ट आता है। अगर एक फैट सीके की बात करें, असॉल्ट उनकी जगह लेगा ही लेगा। और इधर एसी तो नहीं बनाने वाले। हाँ जी, बट इधर तो असॉल्ट क्यूरस आर्मर आइटम्स तो बना नहीं सकते। यू नेवर नो, क्योंकि असॉल्ट भी आर्मर काटता है, एल्डर टाइटन का जो बफ मिलेगा उसकी वजह से भी आर्मर करता है। बट यहाँ पे देखिए जम कितना अच्छा था, डिस्पोज आने की कोशिश, दे वांट टू टेक दैट आईओ एट एनी कॉस्ट, बट आईओ साइलेंस हो गया। बट आखिरी में एक और अटैक, 72 सेकंड्स ले आईओ इज डेड, बट वन मोर शॉट, दैट एल्डर टाइटन इज बैक टू द पवेलियन। बट जो हमारी ब्रूलिंग्स है, जो हमारे एल्डर ब्रू मास्टर की बियर्स थे, वो भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देते हुए दिख रहे हैं और दोनों सपोर्ट अब गेम से बाहर है। वन मोर हिट फ्रॉम दिस स्वेन, LGD आर्मी, he is playing a blunt game. अब CK को दोनों ने सराउंड कर रखा है, but I think it's better you don't fight, क्योंकि nothing to say, got picked off, he made a buyback, and now everyone from Beast Code is also trying to get back, but suddenly I saw a new rotation, वो सीधा रोशान पिट के अंदर आ चुके हैं। but अब प्रॉब्लम ये है कि असॉल्ट क्राइसिस बना चुके हैं यहाँ पे ब्रू मास्टर, अपनी टीम को आर्मर की ज़रूरत देने वाले हैं और उन्होंने सीधा ब्लिंकिंग किया, स्टन करा एंड ही वेंट बैक। और अब रोशान लेना इतना सेफ नहीं होगा, बिकॉज 3 सेकंड के अंदर जिंक्यू आने वाले हैं और सीधा वो चार्ज करेंगे। और अगर वहाँ पे आयो की बात करें, आयो भी 10 से 15 सेकंड के अंदर हमें इस गेम के अंदर फुल पावर अपना इम्पैक्ट दिखाते हुए ज़रूर दिखेंगे। नथिंग टू से का बायबैक है, उनको भी थोड़ा होश संभाल कर खेलना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक कि अब PSG-LGD इस गेम के अंदर कुछ भी कर रोशान के अंदर कुछ इम्पैक्ट दिखा सकती है, बिकॉज जो एजेस है वो विस्पर के पास आई है। या आई थिंक मेक सेंस, बिकॉज आप अगर आइडियली तो SF के पास देना चाहेंगे, बट विस्पर हैज़ बीन डूइंग अ लॉट इन टर्म्स ऑफ इनिशिएशंस एंड एवरीथिंग। और एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस फाइट में एंगेज करने के लिए उनके पास वो एबिलिटीज़ नहीं थे। ब्रू मास्टर विदाउट हिज 3 पैंडास ही जस्ट कांट गो इन, और उसके बाद ना वहाँ पे स्वेन के पास अपना गॉड स्ट्रेंथ था, ना वहाँ पे बैरथ्रम के पास उनका अल्टीमेट एबिलिटी था, तो दे डिड नॉट वांट टू रिस्क इट। एट द सेम टाइम यहाँ पे इसी की बात कर रहा था मैं, और जिस तरीके से यहाँ पे नथिंग टू से को डैमेज पड़ा है, स्प्लिटर को तो कहीं ना कहीं उससे तो बच ही जाएंगे, बट उसके बाद जितने फॉलोअप डैमेजेस उसको नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। आई थिंक दिस वाज अ बायबैक फॉर लेशरैक, एंड अभी ऑलमोस्ट लगभग 80 सेकेंड के लिए इस गेम से बाहर है। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं सपने तो बीस को ज़रूर देख सकती है कि यहाँ पे उनका टियर 2 डाउन करके टियर 3 भी किसी हाल में डाउन कर दिया जाए, क्योंकि अब SF हैज़ बिकम अ हार्ड हिटर। हमें लग रहा था कि शायद SF इज़ नॉट गोना बी गोइंग फॉर दोस डैमेज बिल्ड्स, बट बहुत बीचों बीच यहाँ पे पकड़ा है और देखते ही देखते मेल्ट कर गए SF, और उसके साथ CK को भी सांस लेने का मौका तक नहीं मिला। और PSG-LGD के आर्मे
ओ गॉड क्रैट, पलक झपकते ही वो सिर्फ खत्म हो गया। आपने स्टार प्लस में एक शो देखा है हातिम, उनके पास भी एक ऐसी तलवार थी। बिकॉज उन्होंने गॉस्टन किया, ब्लिंकिन करा एंड उन्होंने मौका ही नहीं दिया। मजे की बात यह है कि अभी अभी आपने बोला था कि ऐसे अब हार्ड हिटर बन चुके हैं, उनके आइटम देख के मुझे भी यही लगा था। बस बीके भी है, उनके पास ड्रैगन लैंस है, डेडलेस है एंड नाइस लेवल, बट स्वेन ने सारे सपने तोड़े। बिकॉज यहाँ पर स्वेन के पास आ चुका था सिल्वर एज एंड दे डिडंट एंटिसिपेट दैट। अगर अब अगले 30 सेकंड विल बी इनफ फॉर देम टू टेक डाउन। देखिए सीधा अंदर गए, दैट डैमेज ओवर एसएफ। ओह माय गॉड, सीके में बहुत फार्म है ब्रो, हार्ट वगैरह है यार। फैंटाज्म करने भी ओह गॉड, ये गेम अगर ऐसे खेलते गए स्वेन तो मतलब, चलिए अब थोड़ी देर में हम लोग को देखने को मिलेगा जो धोबी पछाड़ वाला मार, 2-3 शॉट्स में पूरी एक टीम वाइप हो रही है, रैम्पेज हो रहा है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव अ स्वेन हु इज फैट। एंड नेटवर्क देखिए उनकी ऑलरेडी 23,000 पहुंच चुके हैं, वो अपने अपोनेंट से 3 से 4,000 गोल्ड ऊपर है और जिस पीछे वो भाग रहे हैं। अब लेशरैक को, अब ये लेशरैक की जो गलतियां हो रही है ना, इसको कवर किया है बहुत खूबसूरती से। आराम से मेगा के लिए चांसेस बनते थे अगर स्वेन एंड स्पिरिट ब्रेकर इतना अच्छा इनिशिएशन नहीं करते। एंड दे वर ऑल टुगेदर, बीस्ट कोस्ट ने भी तो गलती की, सारे प्लेयर्स साथ में थे। They were not anticipating, they had no idea कि यहाँ पर स्वेन के पास सिल्वर एज होगा। और एसएफ को तो सपने नहीं आने वाले को, जिस स्पीड से वो गले हैं उनका हिसाब बिगड़ चुका होगा पूरा, उनका सब कुछ लेफ्ट राइट हो गया होगा क्रैट। और यहाँ पे ये एक चिंताजनक विषय तो है ही, क्योंकि इस समय तो एजेस अभी भी बरकरार है, तो कहीं ना कहीं बीस्ट कोस्ट थोड़ा सा और एग्रो खेलना चाहेंगे, बट वो भय स्वेन का तो होने ही वाला है, स्पेशली जिस तरीके से स्वेन खेलते जा रहे हैं अभी तक। फिर से सिल्वर एज का इस्तेमाल एंड PSG.LGD की तरफ से ये जो प्री एंटिसिपेटेड मूव था, ये आई थिंक कहीं ना कहीं डाउन द लाइन बीस्ट कोस्ट के प्लेयर्स मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि सडनली जब वो बैकफुट पे हैं, जब लेशरैक गेम से बाहर है, वो इनिशिएट करेंगे और एक 5-man स्मोक की तरफ बढ़ते हुए जस्ट अराउंड देयर ओन जंगल देख रहे हैं अगर कोई भी प्लेयर उनको मिल जाए। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे ये आउटपोस्ट पे इन्होंने बस कब्जा जमाया और वहाँ पर आई थिंक कि शायद एक आधी वार्ड है जो उनको विजन दे रही है, बट नो द क्वेश्चन। अब ये देखिए मैप का जो सदर्न पार्ट है इट्स एम्प्टी, इट्स ओवर। कोई भी वहाँ पर उस फार्म को कंटेस्ट नहीं करना चाहता, बट यहाँ पे फैंटाज्म यूज़ कर मेरे ख्याल से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। और बाकी के सारे प्लेयर अब फिर से Tier 3 के प्रेमिसेस के अंदर आ चुके हैं एंड द ग्रीन वन द स्पिरिट ब्रेकर जो जिंक्यू है, उन्होंने थोड़ी सी लेन पुश की, ही केम बैक। अब उनके पास जो अगला आइटम को एक बाय में है दैट इज BKB, और उनके पास अभी फेसबुट है, शैडो ब्लेड एंड ड्रम्स ऑफ एंड्योरेंस है, जिससे कि उनको एक डिसेंट टैंकी, एक अच्छे अटैक स्पीड वाला प्लेयर बनाने की भरपूर कोशिश कर देता है। 24,000 नेटवर्क लेकर स्वेन सबसे ऊपर है, उनके पीछे 22,000 के साथ है यहाँ पर CK, फिर 17,000 पे आते हैं हमारे SF। अभी देखिए फार्म में कितना फर्क है कोर 2 कोर 1 के अंदर। ये देखिए इससे सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है कि आपने स्टन मारा और अल्टीमेट पिक ऑफ करा। अब अभी तक ना कोई भी प्लेयर यहाँ पे मरा नहीं है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर विस्पर का मरना इज ऑलमोस्ट कंफर्म। एजेस हुई वेस्ट। अगर आप SF एंड CK मर गए देन आई थिंक आई एम वेरी सॉरी, बट यस SF इज डेड एंड दिस टाइम नथिंग टू से is owning everyone. The Pulse Nova, the Lightning Storm, everything is making a huge impact. First kill, stun, can do something, but it was too late. उनका जो cooldown पे था stun, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, but SF के बिना is it safe to go for a fight? Because CK को भी एक नेक प्लेयर चाहिए जो पीछे से Shadow of Reclaim मार सके और वो fear के अंदर they can take some towers in HP. Tier 1 जिंदा है तो इसका मतलब 45 यूज़ भी करेंगे, तो टावर तोड़ने के बाद जो आपका 45 है वो रीसेट हो जाएगा। अब तो चीज़ें धीरे धीरे हाथों से निकलती हुई टीम बीस्ट कोस्ट के लिए, क्योंकि ये जो SF का जो आइटमाइजेशन था, ये कहीं ना कहीं ये दाल तो गल नहीं रही है इनकी। बिकॉज आई डोंट नो इस पॉइंट पे हाउ डू यू डिसाइड टू शट द प्लेयर्स डाउन। आप क्या हेक्स के लिए जाने वाले हो, हैल्बर्ट के लिए जाने वाले हो, कि एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जहाँ पे इस बार स्वेन का कोई खास तौर पर डैमेज नहीं था, बट फिर से एक और इनिशिएशन हो चुका है। यहाँ पे CK डैमेज देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनको अभी तक के लिए रोका तो गया ज़रूर है। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा डैमेज आउटपुट फिर से आता हुआ, बट दिस स्वेन डेफिनेटली डजंट सीम टू बी फॉलिंग डाउन। लेशरैक को भी बचाया रखा गया है और देखते ही देखते फिर से आमे को मिल चुका है एक डबल किल
और PSG.LGD is looking to be stomping through. ये एल्डर टाइटन तो यहाँ से नहीं बच रहे, जिस तरीके का डैमेज आउटपुट है। हाँ जी हाँ, अब सबको मक्खन की तरह यहाँ पे काटते हुए मारे और they got the advantage of 10k 5000 नेटवर्क की इन्होंने एडवांटेज दी है और ये इसका अब देखिए I want to give credit to the IO. Every time, you know, हर IO हर बार सही टाइम पे सही जगह पर होते हैं and they are standing on the tier 3 taking down those mid barracks and उनका अगर बस चले they can also shift down to the bottom side and दो side barracks वो ले सकते हैं. I think they will be going bottom and that's a very nice decision because they can go for the throne but उनको पता है कि throne के लिए they will be wasting a lot of time but दो barracks लेने की वजह से जो advantage बनने वाली है और दो लेन की टेंशन नहीं करनी पड़ेगी because top का अभी भी tier 2 बचा है but जिस स्पीड से वो ले रहे हैं it will be just another second joke और ये देखिए shadow of Rixlem की वजह से थोड़े टुके but nothing to say. ये जो एक करके मर रहे हैं ना, this can be the biggest blunder of their life. SF died, Marcy died. अब CK अभी भी 6 सेकंड पीछे है. Now they can go for throne. Cause अगर CK आ भी जाते doesn't matter. Cause अब और कर भी क्या सकते हैं. But let's see, PSG की डिक्शनरी के अंदर कुछ और plans हैं. क्योंकि बाकी के जो PSG प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी टॉप 10 जा चुके हैं एंड यू नो विद दैट स्ट्रेंथ गेन ऑलमोस्ट डैमेज इनका 350 का डैमेज है गॉड स्ट्रेंथ के अंदर ये 500 से ऊपर जा रहे होंगे और आपका जो सिल्वर एज है वो आपको क्रिट चांसेस भी देता है इसका मतलब जो इनकी क्रिट्स होंगी वो ऑलमोस्ट 800 से 1000 की होंगी और 3-4 शॉट फटफट पड़ना मतलब सामने वाले का गेम से बाहर जाने से कंफर्म SF अभी भी 40 सेकंड बाद आएंगे क्या उनके पास बायबैक है उनके पास बायबैक नहीं है उनको पूरा शो देखना पड़ेगा एक छोटी गलती और यस दे हैव डन इट एंड डायर अर्न्ड मेगा प्लीज गेम जीजी दे देना चाहिए मतलब अब तो गेम में कुछ बचा ही नहीं है इससे और आप कैसे वापस आओगे Oh, the journey. The game number 1. It was amazing to watch Beast को जिस तरीके से उन्होंने खेला and they surprised PSG.LGD. But second game के अंदर that sweep, third game के अंदर close game, but the Sven, the army factor proved that that it showed to the Beast को that experience matters. और फेथ बियान TI6 विनर विंग्स के साथ खेल चुके हैं और जो हमारे आमे पिछले 3 साल से टॉप 3 फिनिश करते हैं इंटरनेशनल में दे नो ऐसे स्टेज में ऐसी परफॉर्मेंस कैसे निकालनी है कैसे पीयर प्रेशर को हैंडल करना है और अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर वो फर्क लाना है बट आई थिंक मोर देन PSG.LGD प्लेइंग वेल मुझे लगता है बीस्ट को उसके प्लेयर्स कुड नॉट होल्ड ऑन टू देयर नर्व्स करेक्ट बिकॉज स्टार्टिंग बहुत ही अव्वल दर्जे पे हुई थी इनकी और ऐसा नहीं कि कुछ खराब खेल रहे थे बट जो बीच में पिक ऑफ्स हो गए जो बीच में आई थिंक अब देखिए लिटरली एल्डर टाइटन का कोई इम्पैक्ट ही नज़र नहीं आ रहा गेम के ऊपर बेचारे सीखे तो अपना फैंटाजम तक नहीं खोल पा रहे और SF आई डोंट नो कि ये जो डैमेज डीलिंग आइटम्स के लिए गए थे फिर से ऑफ गार्ड पकड़े गए हैं BK भी यहाँ पे चला के कैसे हाल हो चुके हैं देखिए TP करना पड़ रहा है जहाँ पे यहाँ एक बेचारे भारतरम को मारने के लिए इनको इतनी कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है और एक के बाद एक ख़त्म हुए जा रहे हैं और स्वेन ने अपना जो गॉड स्ट्रेंथ चला दिया है जो डैमेज आ रहा है देखिए CK टैग करे तो कितने देर तक टैग करे और इसी के साथ GG का कॉल भी आ चुका है और बीस्ट कोस्ट के प्लेयर्स का सफ़र यहीं पे TI तक का चलता रहेगा और यहीं पे इनफैक्ट आज ख़त्म हो जाएगा और PSG.LGD अपनी जो ड्रीम रन चल रहा है जो आखिरी TI हो सकता है आमे और फेथ बियान के लिए लोअर ब्रैकेट के थ्रू द ड्रीम रन स्टिल इज ऑन या एग्जैक्टली 2018 के अंदर रनर अप 2019 के अंदर सेकंड रनर अप 2021 के अंदर रनर अप सो इस टीम अभी भी रिडेम्पशन में आई डोंट नो हाउ दे गॉट लॉस्ट इन द अपर ब्रैकेट जब सीक्रेट के सामने इनका सामना हुआ था आई जस्ट विश कि ये टीम यही कंटिन्यू वॉर करे एंड दैट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट द ब्यूटीफुल नेचर ऑफ ई स्पोर्ट्स की वो अकेले खेल रहे थे सब आए उनके साथ मिले हैं कि यू नो दे प्लेड अ गुड गेम PSG के सामने बीस्ट कोच का नाम कौन जानता है सी स्माइल को कौन जानता है बट इस प्लेयर ने धुआं ढा दिया था गेम 1 में एंड आफ्टर दैट गेम 3 एवरीवन सो हैप्पी फ्रॉम PSG साइड दिस BO3 gave me some serious moments of chill मज़े तो काफ़ी आए बट आई थिंक यहाँ पे बीस्ट कोस्ट का जो एक सफ़र था इंटरनेशनल में मैं कहूँगा अभी तो बस शुरू हुआ है इन द सेंस कि पहली बार आ रहे हैं साउथ अमेरिकन टीम है इतना बेहतरीन इन्होंने खेला है
और आगे चल के प्रीटी श्योर कि जब नेक्स्ट TI में आएंगे इससे भी कुछ अव्वल दर्जे का या परफॉर्मेंस दिखा के जाएंगे, क्योंकि इविल जीनियस जैसे टीम को यहाँ से बाहर निकाला सिर्फ उन्हीं को नहीं, कितने सारे टीम्स के अगेंस्ट खेले। मेन स्टेज पे हमने देखा पहले हुकोरी के अगेंस्ट गए थे, फिर वहाँ पे इविल जीनियसेस आए, उनको यहाँ पे दे बाहर निकाला, फिर यहाँ पे PSG.LGD शायद उनके लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट ऐसा भी चांस था कि ये गेम उनके लिए जा सकता था। मैं तो कहूँगा जो गलतियाँ बार बार करे और आमे भगवान स्वयं प्रकट अगर हो रहे हैं भगवान की शक्तियाँ लेकर, तो कैसे रोकोगे? जब मामला खुद के हाथ में ले लिया था आमे ने, उसके बाद आमे ने एक मौका नहीं दिया। The only time जब हमें डर लगा था जब मिड पे मरे थे, but I think ये गैंग पे मुझे लगा था कि yes this is something जो अब प्रॉब्लम देगा, बिकॉज सुबह जॉनी ने एक नींबू काटा है इनके लिए कि भाई व्हाट इफ क्रैट बीस्ट को PSG हरा दे और एस्टर भी हार जाए, चाइनीज रीजन बाहर हो जाएगा। तो मैंने कहा जॉनी की बात सही हो सकती है, बट ये जो फाइट थी ना यहाँ पे आई रियलाइज कि दे डोंट नीड लेशरैक, दे डोंट नीड एनीथिंग, उनको बस स्वेन को बस एक आयो चाहिए उनकी बैक पर, एंड वो पूरी दुनिया से अकेले लड़ने की अपनी टीम के लिए। एंड कहीं ना कहीं वो जो रोश फाइट के बाद इनको जो ओवर कॉन्फिडेंस मिला कि चलिए लैश तो है नहीं, अब ये तो पुश करने के हालत में नहीं है, ये जो बिग बॉल्जी मूव्स और ये जो डिसीजन मेकिंग PSG.LGD की रहती है ना, यही उनको खास बनाती है एज अ टीम। ये यहाँ पे जो कैलकुलेशन की और यहाँ पे गलतियाँ भी तो की है बीस्ट कोस्ट के प्लेयर्स ने, वहाँ पे क्या जरूरत थी 2 प्लेयर्स को ऐसे स्टिक करके, उनके 2 मेन कोर्स एक दूसरे के बगल में चल रहे, आया एक स्टन 2 स्टन हुए और ऐसे ही गायब हो गए। बट रिगार्डलेस फेथ बयान का भी काफ़ी अच्छा गेम, बट ये देखिए आमे को, एंड मैं देखना चाहता हूँ कितना ज़्यादा डैमेज डील किया, क्योंकि एक पॉइंट पे यहाँ पे लिंकिंस भी उन्होंने अपने लिए बना रखा था कि ताकि वो जो लासो है वो उनके तरफ ना आए, एंड वन ऑफ द स्पेल्स जो आई थिंक उनको थोड़ा सा भयभीत रखता था, बट that's pretty much. In the end, he even picked up a satanic. मतलब you also know that कि जो basic Swain की armory होती है that require a lot of assault crosses होता है, साथ साथ deadless होता है, तभी जाकर Swain का एक proper output निकलता है। तो for the assault he let Brewmaster handle it. For the deadless उनका eco silver edge काम कर रहा था, उनको सारा overcharge और movement speed थी, war cry और आयो ने संभाल रखा था, सो उनको बस फ्री हिट लेने थे। सबसे पहले मार्सी को बाहर निकालते थे, फिर एल्डर टाइटन, फिर विस्पर, फिर सीके की बारी आती थी, फिर आखिरी में आते थे SF, जो मोस्ट ऑफ द टाइम अलग ही खेल रहे होते थे। SF तो पहले ही खत्म हो जा रहे थे। अभी ना 20 को उसने एक गलत गैंग खेला, बस एक गलत गैंग, उनका तीनों साइड मेगा करा। उसके बाद यू रिमेंबर जब SF ने जंगलों के अंदर अल्टी मारी थी नीचे, SF वहाँ पिक ऑफ हो गए, मार्सी पिक ऑफ हो गए, एवरीवन फ्रॉम द LGD साइड वेंट टू द टॉप, उन्होंने टॉप का भी मेगा कर दिया था और SF जिंदा भी नहीं हुए थे। उसके बाद तो क्या ही था, जब आप एक एक करके जाओगे तो भाई डोटा टीम गेम है, ऐसे आप खेल नहीं सकते हो। एंड वो भी देखिए SF जस्ट रिसेंटली स्पॉन हुए हैं, उनको भी थोड़े बहुत सोल्स चाहिए रहता है जस्ट फॉर हिज अल्टीमेट टू रियली डू सम डैमेज, एंड यहाँ पे बात वही बन के आ जाती है, क्योंकि मुझे वो रास नहीं आए कि इनको ड्रैगन लैंस जाना, फिर डेडलस हार्ड हिटिंग डैमेज आइटम्स जाना, क्योंकि ही कुड हैव गॉन फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स राइट। चाहते तो एक हेलमेट भी बना लेते एटलीस्ट, स्वेन वुडंट हैव बीन अ थ्रेट फॉर सम टाइम आफ्टर हिज BKB, या फिर कुछ भी यूल्स भी बना लीजिए, यूल्स के लिए अंदर तो आप जिंदा भी रहोगे, जो सिमिलर चीज लेशरैक ने किया था, किसी को भी ऊपर उठा दीजिए, कॉम्बो चलता था एक टाइम पे, उठा दिया नीचे गिरे और रिक्वाइम ऑफ सोल्स फटता है, BKB चला दीजिए, काफी चीजें कर सकते थे, सेप्टर बना के वो थोड़ा एक्स्ट्रा डैमेज, क्योंकि डैमेज के लिए तो आपके पास सीके थे ही थे, क्योंकि वहां पे SF का फेल होना इट सॉर्ट ऑफ बिकेम लाइक वो जो अकीलीज हील्स आप कहते हैं, बट हमारे तरफ से तो आपको मिल चुका है हमारा जो भी टिप्पणियां थी इस गेम के बारे में, बट इंटरव्यू में चलते हैं, प्लेयर्स का क्या कहना है ये देखेंगे। This game, this build best of 3 is very important to me and to our team because it's a lower bracket. If we lose, we go home. So and it might be my last game. So when game 2, we just play the confident hero and be ourselves. Don't be afraid. Don't be afraid of lose. So we pick X and we did a good job. Speaking of being confident, your draft in this last game, in game 3, was also out of the norm for both teams. You played so confidently, and all of us backstage were saying, based on this draft, this team feels really, really good about their chances.
yeah, we have some great performance, but we also made lots of mistakes. Yeah, but also we did a great job. But we will improve ourselves in next game. What do you want to say to all the fans who have been watching your entire career and are just thoroughly enjoying getting to watch you here at TI11 before you retire? Thank you so much for watching me or watching our team play, and I hope everyone can feel happy and feel the. Sorry, I heard my son. I know, we're hearing him in the area. Can feel the spirit of competition, yeah, of esports. Congratulations. Just a legend. I love talking to you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Back to you guys. A legend indeed. Casey says it right there. And the pressure that must be on not just you, but your entire team, knowing that this could be your last or your teammates' last professional Dota game. The same will be for Matumaman, who's playing in our next matchup. He also is planning to retire, and he will be taking the stage next right now. They started out in the upper bracket, got dropped down quite rapidly, and after that has begun their route in the lower bracket. Yesterday we saw them take out Entity in 3 games. Can they do the same to OG? We're going to find out. Their opponents coming up next. We got a lot of first-timers coming here on stage with OG here. The opponent for Team Liquid, OG has the same route as Team Liquid, starting out in that upper bracket, getting dropped down, and yesterday as well, a 3-game series also against a Western European team. That's right, we got a little bit of a Western European DPC bracket going on here. Which one of these two will come out victorious? I think it's very hard to tell. And I also know that there are a lot of people that are either going to be happy or the way or sad either way, because there's so much love between these two teams, Effie. Yeah, particularly between Taiga, who he was the former support player of Team Liquid before he joined OG, and of course the rest of Liquid. They're constantly showing each other support online, constantly hanging out with each other. It's just really wholesome and really sweet. The younger members of OG, of course, were not really around for that kind of friendship, but I'm sure they watch it all and they feel that same amount of appreciation and respect. They must do indeed. We know that when OG faces Entity, that Taiga also gets into it with wanting to face the old creep wave lads, and I bet that goes the other way around as well. A lot of love indeed between these two squads. One has to come out on top though, Jenkins. And you said you had the record for it. It's very close. It's 12-10, I believe, in favor of Liquid. 12-10 in favor of Liquid. Yeah, they did play quite a lot throughout this this year. They met 9 times, I believe, and yeah, in the group stage as well. Liquid, pretty close game. Both of those games were very close, a bit longer than the average game time. But Liquid came victorious after that one. This is going to be a close series because these two teams know each other inside and out. Like they come from the same region. They played so much. As you said, friendship probably their #1 scrim partner as well. Yeah. And yeah, it's just going to be very interesting to see how both of these teams approach draft. I think in game 1 you are going to be able to give them a little bit more like a surprise factor. You are able to experiment a little bit more because you know, it's a game 1, so both teams are going to be a little more looser on that side. So what's going to be important when we're watching this game 1? What are you going to look to, Effie? What do you want to see from these two teams? So for me, I want Liquid to play a high tempo style of Dota.
like we saw yesterday when they played that Lifestealer, when they played it with the Spirit Breaker and they just ran around the map and demolished, that's what I want to see coming out of Liquid, because OG, as we've talked about time and time again, tend to play a slower style of Dota. They tend to be incredibly farm heavy on all 3 cores still, even in this patch, and they do have that window, that first 25 minutes where you can take advantage of them, take advantage of their greed. Unfortunately, their laning phase is incredibly strong, so it starts with the lanes, you play the tempo, and you try to not get outplayed over the map the way OG have always done it. And I feel like you could argue like both of these teams, I mean, we saw with Liquid being the last chance qualifiers team before, where they, you know, weren't quote unquote good enough to make it through on DPC points or through the regionals or whatever. They become the last chance qualifier team. All of a sudden, these guys are top 6, potentially getting into the grand finals, whatever. I think OG and Liquid both have looked good in their lower bracket series. You could argue like, oh, lower bracket, you know, they're the teams that lost. I think Gaiman and Entity both showed up in the lower bracket series, and that's why those went to 3 games. I don't think it's because it's like both teams are equally struggling and therefore in the lower bracket. I think the lower bracket empowered all of these teams, which we've seen before from OG, and then they literally win. Yeah, it's a different squad, but I feel like the mentality of the team, even though they swapped all 5 players, is still the same, because they do have Seb and No-Tail behind them. Like, they're gonna give them every bit of experience that they can and try to lead them into this victory, because they've been in this rough situation, we can call it, so many times, and they know how to perform under pressure. And the way OG like started, like, you would expect them to have a little bit more time to adjust a new LAN environment, playing in front of the crowd. And then at the Stockholm Major, they come in and they take the whole thing, which was pretty impressive. Right, and that was through the lower bracket, right? Yes. And then they win the ESL One Malaysia third-party non-DPC tournament in such a convincing fashion too. And the interesting thing about OG that we never mentioned is that these players are new. They are new to the TI stage. Even though OG is an old organization, these players are still fresh and they are performing so well under pressure. And they are going to have to perform well right now, because it is time for the draft of the first game. Let's head over to MLP, John Expire, and Celery. Team Liquid's Team Liquid versus OG. OG's turn to Game 1. Yes, ladies and gentlemen, welcome back. We are going into our next best of 3 series here between Team Liquid and, of course, OG. It is MLP Dota. It's John Expire, and of course, we have the lovely Celery. Celery, how the hell are you feeling? Feeling okay. Would rather not have been here, but it's nice. I get to watch them play again. Absolutely. What about you, Jonathan? How you doing? Doing great. You know, we had great Dota yesterday, and we were honored and privileged to have Celery on as well. And, you know, we've got more great Dota coming up here. So a lot to watch out for, a lot in the line. Celery, you played against OG, you know, you've got a feel for it. How do you feel about this matchup against Liquid? I saw a bit of the Liquid games as well yesterday. I think if they play quick, they should have a good chance against OG. Like the panel mentioned earlier, OG plays a bit slower than most of the European teams. Yeah. So you can punish that with early aggression and taking over the map. Yeah, and we'll see if they can do that. We do see that Enigma ban. We were talking about that a little bit. You know, Liquid have been sticking to that for Zai, so they actually do prioritize it. But that leaves a lot of options. You know, Marcy, Primal Beast, the 2 straight bans. They will take care of the Primal Beast here. Marcy first pick, you reckon, just a safe play? It's hard to say. Maybe. Yesterday, Marcy and Primal were banned in every game against Liquid. So we don't actually know if they will prioritize it the most. But most teams prioritize the Marcy a lot. It's been doing really good this tournament, so I reckon we'll see it. Well, you can appreciate the ban as well from OG, just getting rid of that Enigma that we saw. I mean, Zai, how many times this man just picked this hero? And we talked about it yesterday in the series with Liquid, right? Like, it's the fear of God, just not knowing when the black hole's coming, and it just, even if it never gets thrown out, you've got to be wary of it, and there's the Marcy. You guys just talked about it. A very contested hero right now. No surprises, it gets first picked up here by Liquid. Yeah, it just provides so much, right? Like, you've got a lot of mobility, you've got a great steroid for your core, you've got the flexibility in running this here in any position. OG into the Lesh, which we saw a lot of in the last series as well, and the Lich. So they've got a lot of good magic damage coming out, some really good timings to play with, and some ways of mitigating that physical output here, right? Yeah, this is a combo that has been quite popular this TI, for the Lich and the Lesh. I was thinking, whenever I see this myself, I think, oh, it's a nice game for Ench. You can purge his shield. But
they just opt for the Lina instead. It would be nice for them if they have some way to purchase his shield at some point, because this Lash can be very tanky. Parts of the game with the Bloodstone. Yeah, like that timing with the Bloodstone just enables this hero so much. The Lina response, we've seen a little bit of this, right? And I think it was Gunnar yesterday saying that a long-range mid is kind of a nice way to handle the Lush. You've got good wave clear, good ways of keeping up and farm here. And with the Marcy, you've got even more right-click damage if you opt for that route. Yeah, I suppose they'll probably put the Lina mid against the Lash. That's probably what they're aiming for. They might, if they have good roaming supports, they already have the Marcy. They might try to punish this Lash on the mid lane, because he is quite fragile. He will die to a Marcy stun. Yeah. We talked about that pacing just a little bit as well, right? And the panel pointed out OG does like a little bit of a slower game. Do you want to see Liquid kind of pick up the pace? Do you feel like Lina Marcy is maybe a good foundation to run a faster draft against that? Yeah, it's a solid start for sure. The Lina technically is still flex as well. I think Boxy also likes to play this hero, so it's hard to say. If they maybe can get their hands on a Beastmaster or something to up the tempo, I think that will be really good for them. Final ban now for OG before we do get into some more picks. I do love myself some predictions, and it obviously makes you guys look fantastic. Is there any hero predictions right here, right now? What do you think's coming up there? 5 seconds. Give me anything. A pick, right? Give me a pick. Just give me a pick. I feel like a Nyx could kind of slot in here if you wanted it. Always go for the Nyx. I mean, you've got Leshrac, you've got Lish. It's a pretty good hero. Spike Carapace is going to feel good. Manaburn's going to feel great against Lesh. And to protect the Lesh, we have seen Nyx first phase bans for first phase Lesh anyway. Yeah, Nyx or Clock would be nice for OG here probably. They both have the same function of a bit more frontline. They're good against the Lina as well. Nyx is also good against Lash, so they would take it away from Liquid as well. Scares me when someone agrees with John X5. That's a very scary moment for me. So don't feel the need to agree with him. Trust me. You go your own ways. They are using quite a bit of reserve time here for this final pickup. Very curious to see where they do end up going. It seems like they are just focused on the off lane right now of Team Liquid. I mean, Zai is such an impactful player for the side of Liquid. You just don't want to give him a good game. In fact, they do get rid of the Lone Druid as well. Obviously, a Matumba man special, you don't want to give him that kind of comfort. OG, they'll have their first third pick. Let's see what it's going to be. Both of you guys mentioned the Nyx. I believe you mentioned the Clockwork as well, that we have been seeing quite a lot of recently. See if they do go for either option. Of course, Tiger performing perfectly on either of those heroes recently, and be a real treat to watch him on it. Yeah, I think the one thing as well for Liquid that's left available is this Spirit Breaker Lifestealer combination, or just a Lifestealer in general. Matumba's been showing a lot of prowess on that. OG, they do pick up the Shadow Demon, so they've got a nice way of controlling some of these heroes. Good setup for the Leshrac down the line, maybe a little bit more push coming out as well, and some defensiveness from that disruption here. Yeah, that's very, very interesting. I was thinking for Liquid, Insania also likes these type of heroes, the Shadow Demon, the Bane. And I thought it might be a pick for them against the Lash and the Lich, because the Lash cannot move at all. It purges the Lich shield. It's very good against these heroes. But OG opt to pick it up instead. They do have two very defensive supports now, so they need to make sure they get some heroes that want to go in on the last two picks. Otherwise, you have three heroes that are not really starting the fight. Is it hard going against OG, Celery? Like, you've played these guys so many times, like with these kind of weird styles of drafts and the versatility these guys have, like, is it hard to draft against a team like OG? You cannot be afraid. You just have to go. So don't get caught off guard. Just do your thing. Undying is the pickup here from Liquid. Obviously, Undying, a very, very popular hero. You drop the tombstone, your job's done. You can happily die afterwards. Just so hard to deal with as well. Like, even as a pos 5 Undying, it's just such a tanky hero to have to try and deal with. Team Liquid, they do get away with it. I wonder what they follow up with here. I mean, it's still fairly open. You've got the flex, right? Marcy could be offlane, Undying could be offlane, one of these could be our supports, both of them could be our supports. So it's really open for Liquid to kind of determine what they want in their lanes. I think with the Undying pick as well, you don't have a good way of clearing out the tombstone here. So it's always going to be a massive issue in the middle of these fights. You're not fighting against strength heroes, you're not sapping away damage, but these are not the highest strength scaling heroes either. Yeah, I think the Undying pick is very cool, because they know the heroes that OG needs right now are the initiator heroes. Maybe they want to go up for something like an SK again, and Undying will destroy that hero in lane. So they block a lot of the picks that OG could go for. And that Drow Undying lane, it's really potent as well, right? Like, it's just so hard to deal with once you hit that level 2 mark. You've got the Tombstone, you've got the Decay with the Frost Arrows, and
I don't know, is there a particular offlane hero you'd personally like to see here, Celery, like for ATF to try and counter out? Because it seems like this kind of lane is very hard to deal with. It seems like Liquid banned for this. They probably had this in mind. They banned the Mars, they banned the Slaughter. Both heroes that can be very problematic for a hero like Drow. So let's see, there's still always the Timber. I don't think it's good in this lane. Amar really likes his SK as well, but I think he's gonna have the same issues that he had when he played us yesterday. He won that game, so maybe it's just a pick. But, still fairly open up. Is there a chance maybe for like a Razor? I know it's not been as big in the offlane, but you know, Razor against Drow, if you can gap close, you've got the Shadow Demon to set up. Could be one way, I suppose. To go to Centaur instead. So it does come out. All right, sell it to me, boys. Aghanim Scepter, Centaur. Is it possible? Could it happen? On the main stage, please tell me it could happen. With the Leshrac, it sounds pretty good, right? You're just standing there, you're invulnerable, you're protected, and you're just doing a lot of AoE damage. It wouldn't be bad. It's quite the gold investment for that. Maybe like I mean, the fifth item. Amar loves the farm, he loves his Midas. Who knows? Oh, I'll be praying the whole game to see a Roshan with an Axe Blessing or something. Just give it to ATF, give us the memes, please, OG. We are going to go into those final bans here between these two teams. Nagasara banned out for Liquid. We see the Beastmaster being removed by OG. A couple more bans to come. Is there any particular heroes you guys think would slot in very well with these last picks for this draft? 5 seconds remaining. So Liquid still looking for an offlane, most likely. They could still flex the Marcy on offlane and pick up Boss 4. A lot of offlaners have been banned already. Yeah, I think maybe if you look at what Boxy likes to play, something that can tie in with the Marcy aggressively could be nice. I believe the Tusk is still an option on hand. Maybe double melee doesn't feel too good against two ranged supports, and maybe a ranged core down line here for OG if they want that. But I think it's just the potential for aggression, right? Like, you've got so many ways to jump in. You can kind of cut off that backline save, try to play for the burst. And just looking at Liquid's draft overall, going for the Drow with Lina, the marksmanship on Lina, not the best. You're in interior, but it's just more attack speed. The right-click Lina build-up could feel really good here. And OG's solution is really just what? This Stampede away or blink forward with Centaur. Yeah, the Lina mid looks very potent here for sure. One cool thing Liquid could do is lane the Marcy offlane with Lina support. I think that's a pretty good lane here, and they could go up for something like a Pango mid. It looks like a pretty good Pango mid game. He kind of ruins all the backline from OG. They have nothing to stop him once he's rolling. With his Diffu, he's also very, very good against Lesh. I think that could be a really good pick here. See if they do go for it. OG, one more ban to go before we can finish off these drafts. Think about it. I mean, it can be a bit confusing again because of the flexibility of Team Liquid's draft here. Maybe just another offlaner to get banned out by OG before we do get going. Because you just want to make sure you don't kind of get run over. We saw the Beastmaster banned out in the Lone Druid. You just don't want them to be able to set a pace that you can't keep up with here for the side of OG. Very, very scary when you're dealing with heroes like the Undying and the Lina and the Drow. And they just, if they get a decent laning stage, they just kind of go off and can set a pace you just can't keep up with here as OG. There's 10 seconds left for this last pick up there, thinking about it. I'm not seeing a clean way for OG to kind of tie up that safe lane here, Celery. Anything that comes to mind for you that kind of handles how far Liquid can kind of hit with Lina Drow? I mean, it's hard to say. He plays a lot of heroes. It depends. They do go for the Pango. Wow. Yeah, good call on that flex. Interesting. I'm not sure what OG needs right now. I think they're missing a lot of things in their draft right now. I think it's going to be really hard to deal with the Pango. Bloodseeker is still in the pool. It's gonna have a pretty good lane, I think. Late Bloodseeker, that might be one of the heroes to have to go for. It's very good against Drow as well. Whenever you rupture this Drow, he will get threaded by Bloodseeker in the mid game. They'll go for the Slark. There you go. OG looking very, very good here with this draft. I mean, both drafts are done now. I'm going to ask you both the hard question. Which do you think is the better draft going into this game one? If you had to give me an answer. Ooh. I really like Liquid draft, but they put the Pango on the offlane. I don't really like that. I think I'll still go with them. I really like the draft they have. I'm not sure. Yeah, I'm with Celery. I think just seeing how far Liquid can reach with Drow Lina, even though the Pango is off lane, not going up against the Leshrac, Lina versus Lesh is still a really nice lane to have. Maybe you get a little bit more now out from OG with a Slark. Like, you're not going to be completely zoned out just by the Pango and his spam. You've got some counterplay there with the Lich, which can be really aggressive. But I think Liquid's timings just look a lot sharper. And OG, those issues you mentioned, just jumping the backline outside of Stampede or Blink is still going to be a bit difficult. Yeah, it's going to be very interesting.
It's going to be a very, very interesting game. Of course, we do have the coach of Liquid standing ready with Slack, so we're going to head over to them and see what Blitz has to say. Hello there, ladies and gentlemen. I am here with Blitz Dota. So good to have you again. Another tournament, another year, another Liquid versus OG. You faced these guys so many times before. Do you feel like you kind of know what they're going to bring out, or are they surprising you, especially at this tournament? I mean, this is their first Leshrac pick, I think, in the entire tournament, so that was a little bit surprising, but not wholly unexpected. But yeah, I mean, we have a lot of familiarity with them. Obviously, Tommy was on our team, so... Now, I know that your heart must be racing seeing that Centaur pick. The cart is extremely powerful. It is extremely viable. Will this be the first time that we see the Centaur cart? Are you ready for it? Yeah, absolutely. It's super sick, especially since you suggested it, so I hope they just straight up rush it, no other items. Yep, me too. All right, fantastic. Will we see the first card? Will we see Liquid coming out ahead? I hope so. Thank you so much, Blitz Dota, and we will run right into this game. Game number 1. Well, thank you so much, Slacks. We do get into it. Game number 1 between OG and Liquid, these fan-favorite teams. One of them has to go home today. Boys, it's an absolute pleasure casting with you both here at TI11. I can't wait to get this one started. Talk to me. I mean, we've already discussed the drafts. We've got a straight-up pause. This is a classic SEA pause, by the way, Celery. This is how you cast SEA Dota. But what are you thinking? Like, going into this laning stage, is there... Alrighty, हम आ चुके हैं देवियों सज्जनों हमारे सेकंड BO3 के तरफ और जैसे ही हमारे इंग्लिश टेस्ट ने बोल दिया है this is a battle between two of the most fan favorite teams, the online gankers against Team Liquid. और Mr. Kratu, my darling, ये ड्राफ्ट देखने के बाद पैनलिस्ट ने तो फेवर किया है लिक्विड को, बट आपको क्या लगता है? आपके ओपिनियंस हम जरूर जानना चाहेंगे। ओके, लिक्विड के पास आई डोंट नो व्हाई दे फोकस्ड ऑन लिक्विड। मुझे तो ओजी का ड्राफ्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है, स्टेबल, बहुत कुछ डिपेंड। स्लार्क इज नॉट अ वीक कैरेक्टर, नॉट सो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, समवेयर इन बिटवीन। ब्लड सीकर जैसी रेंज में मैं स्लार्क को रखना पसंद करता हूँ। सेंटर इज अ ग्रेट ऑफ लेनर, लेशरैक इज द बेस्ट मेड राइट नाउ, तो बेटर है। बट अब पैंगो थोड़ा मेटा पिक्स अगर देखेंगे ना तो वो लिक्विड के अंदर ज़्यादा है, बिकॉज अभी अनडाइंग हो गया, पैंगो हो गया, लीना हो गया, मार्सी हो गया, ये बहुत ज़्यादा पिक्स चल रहे हैं अभी। तो मे बी दैट्स द रीज़न पैनल ने सोचा है कि लिक्विड होगा, बट एंड ऑफ दैट इट्स ओजी। यू डोंट नो बट दे कैन ब्रिंग अप टू द टेबल। सो आई थिंक अर्ली गेम फाइट पोटेंशियल टीम लिक्विड की काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक ये चीज़ डेस्क भी डिस्कस कर रही थी कि ओजी इज़ वन ऑफ दोज यूरोपियन टीम्स जो थोड़ा सा बाकी यूरोपियन टीम्स के कंपैरिजन में स्लो खेलना पसंद करती हैं, तो थोड़ा सा डिले ज़रूर करना चाहेंगे राइट ऑफ द बैट, जैसे हम लोग एंटिसिपेट हमेशा से करते आ रहे हैं। और इस टीआई में तो काफ़ी ज़्यादा ही हो रहा है, बहुत सारे स्मोक गैंग्स हो रहे हैं। अर्ली फाइट्स टीम्स लेने में बिल्कुल भी नहीं कतरा रही हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डीप वार्डिंग जाय ने कर दिया। कल हमने जाय का बहुत ही अव्वल दर्जे का एनिग्मा देखा था, एंड अब इस बार पैंगो लियर पे उन्होंने अपनी मोहर लगा दी है। फिलहाल के लिए इंटरेस्टिंग रहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे टीम लिक्विड थोड़ा अर्ली गेम स्नोबॉल करती है। और I don't know why Boxy plays Marcy when Boxy can own everyone with Spirit Breaker. I mean, चलिए कुछ ना कुछ तो ड्राफ्ट सोच समझ के ही लिया होगा, ऐसे नहीं कि आपने ही खुद बोला था। जेरैक्स जी हैं जो अभी ड्राफ्ट किया है, उन्होंने अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट जिनके साथ उन्होंने टीआई जीता था। तो चलिए ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है, और दो क्वाइट अनकन्वेंशनल पिक्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे टीम ओजी की तरफ से। एक है आपका शैडो डीमन, दूसरा है आपका सेंटोर वॉर रनर। तो कहीं ना कहीं आप अगर बात करें, ये जो डिस्टेंस की आप बात करते हो कि ये एक हमारे बीच में डिस्कशन चल रहा था कि हाउ आर दे गोना क्लोज अप दैट गैप, क्लोज अप दैट डिस्टेंस बिटवीन ड्रॉ और मे बी लेट्स से लीना। आई थिंक द आंसर इज राइट देयर, सेंटर वॉर होने के साथ, और इवन आप स्लार्क के पास एक्स आ जाता है तो वो जो एक ओलंपिक्स की छलांग लगाते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मतलब देयर आर वेज।
आई टोटली एग्री विद यू बिकॉज सेंटोर का स्टैम्पीड हो गया, स्लार का जो पाउंस है सेप्टर वाला बहुत ज़्यादा रेंज लेकर आता है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे ड्रो या लीना को कैच करने के लिए। बट इट डिपेंड्स, अभी तो लेन फेज है, लेन फेज के अंदर बहुत अंदेशा हो जाता है कि कौन सी टीम कितना एक्सेस लेती है। बट मिकी ने ऑलरेडी बीजीएम को हरास करना चालू कर दिया है, और जो क्रीप लेन्स भी हैं उसके अंदर भी लीना के पास एक सर्टेन एडवांटेज यहाँ पे मुझे आते हुए दिख रही है। लास्टेड सिक्योर एंड डिनाइज के अंदर 6-3 चल रही है लीना। वहाँ पर लशरैक की बात करें, लशरैक के हिस्से में बस अभी तक एक ही क्रीप आया है। इट्स नॉट लुकिंग गुड। वहीं पे टाइगा एक लेन लेकर आ रहे हैं, इनसेनिया एक लेन लेकर आ रहे हैं, एक अलग ही डोटा चल रहा है। ये क्या चल रहा है? टॉप के दोनों लेच खींच के लेके आ गए। और वो टाइगर को देखो। ओ, यही तो नशा है देवी और सज्जनों, क्योंकि यहाँ पे लैश, ऑब्वियसली लैश और लीना के हमने लेन्स बहुत बार देखे, एंड लीना ऐसे बहुत ही कम मिड्स होते हैं जो कि कभी लीना के अगेंस्ट लेन पे टिक पाते हैं। मतलब आप कौन कौन से वैसे मिड हीरोज प्रेफर करोगे, क्योंकि लीना इज सो स्ट्रॉन्ग अर्ली ऑन। लीना से अगर आपको जीतना है तो 2 टाइप की लीना खेलना पसंद करते हैं लोग, या तो स्टन या तो ड्रैगन स्लेव। आपको कुछ भी करके वो दोनों को स्किप करना है, और अगर आप एक अच्छे मिड लेनर हो देन आपके लिए रेंज क्रीप की वैल्यू हमेशा रहेगी। तो लीना, आप कभी ध्यान देना कि लीना अगर रेंज क्रीप को लेना चाहेगी ना तो वो अपने स्पेल से लेगी, बिकॉज उस क्रीप को मारने के लिए लीना को बहुत अपना रेंज कंप्लीट करना पड़ता है। लीना का अटैक एनिमेशन बहुत धीरे होता है, तो अगर आप वो स्किप कर सकते हो फ़ायदा हो सकता है। अगर मुझे कभी लीना को हराना हो तो मेरे जो आइडल हीरोज़ होंगे वो पज हो सकते हैं, बिकॉज लीना स्क्विशी है, और टिंकर हो सकता है, कुंका स्ट्रेंथ हीरो है। और मीली के अंदर ऐसा होता है कि आप अगर एक आधी लेन में क्रीप डिनाई करने लग जाओ तो थोड़ा तो इंसान नॉय होकर गलतियाँ कर ही देता है। बट अभी के देखिए जाई ने काफ़ी प्यारा सॉच बकल मारा एंड उन्होंने मिशा को कर दिया है पिक ऑफ काफ़ी कम एचपी के अंदर। अभी वो यहाँ पे होल्ड बैक करेंगे और लास्ट हिट लेने की भरपूर कोशिश करने वाले। उनको टैंगो दिया है लोन पर और वो टैंगो खाकर आगे बढ़ेंगे। और अमार वहीं पर माटुम्बा मैन के पीछे पड़ चुके हैं और उनको पता है कि यहाँ पे माटू को फार्म करने बिल्कुल भी नहीं देना। अगर माटू किसी भी तरीके से फार्म कर गए देन यहाँ पर जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी ओजी के लिए, बिकॉज माटू के पास वो एक्सपीरियंस है जो इंटरनेशनल टेस्ट पे चाहिए होता है हर एक टीम को। और गाइस दिस इज़ द सेकंड BO3 ऑफ इंटरनेशनल। डे 4 हमारा चल रहा है आज का दिन लोअर ब्रैकेट्स का, और जितनी टीम आज हारती जाएंगी उनका इस टूर्नामेंट से सफ़र ख़त्म होता जाएगा। जितना थोड़ा हमें लीग समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है कि माटुमा मैन का ये आखिरी इंटरनेशनल हो सकता है। और आई होप कि वो आई डोंट नो कि वो ये उनका आखिरी BO3 है या इसके बाद वो कभी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट जब भी खेले आई जस्ट विश कि वो ढेर सारी मेमोरीज और गेम को एंजॉय कर सके। बट अब ये देखें कितनी ज़्यादा HP का ऑलरेडी उन्होंने बफ डैमेज दे रखा है। टाइगा एंड माटुम अमार ने मिलकर यहाँ पे ड्रो को मार दिया है। अब देखिए बॉक्सी की HP कितनी कम हो चुकी है और अब बॉक्सी लास्ट मोमेंट पे अपनी बेस की तरफ जाकर और इम्पैक्टफुल कुछ गेम दिखाना पसंद करेंगे। बट लिक्विड के जो इंसेनिया है वो अनडाइंग खेल रहे हैं, उनके पास अभी 40% HP है और 20% माना है, बट उनके पास मैंगोज है जिससे कि वो मैंगो यूज़ करके डीके स्पैम कर सकते हैं। बट बटुम्बा मैन का यहाँ पे पिक ऑफ होना एक बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है। बट ओ माई गॉड दैट लास्ट डिनाई का जो डिफरेंस है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ऑलमोस्ट 300 गोल्ड का यहाँ पर फ़र्क आ गया है। युरागी ने कल एक वॉइड खेलने की गुस्ताखी की थी, वो बहुत ही वीक वॉइड था एंड आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम युरागी। युरागी के पास सब कुछ होने के बावजूद युरागी ने वो कहीं ना कहीं गेम प्ले के अंदर कमी दिखाई दी। बट ये देखिए लीना को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर किस चीज़ का उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए था, और एक और लाइटिंग स्टॉर्म विल बी इनफ। ये तो गए जाने से पहले लेशैक को उन्होंने डैमेज तो दिया, बट इट वाज अ नाइस गैंग फ्रॉम टाइगा। टाइगा का कुछ ऐसा प्लेयर पूल है, जब टाइगा का मूड चलता है, टाइगा का गेम चलना चालू होता है, टाइगा का गेम मतलब अलग ही लेवल पे चलता है। हमने पहले भी देखा है, जब पहली बार हमने ओजी को अपर ब्रैकेट पे देखा था तो ओजी अफसोस उस टाइम उस दिन वहाँ पर बड़ी बुरी तरीके से गेम से बाहर हो गई थी। बट लोअर ब्रैकेट के अंदर टाइगर ने जो नेक्स्ट असैसिन और आकल सब खेल के दिखा था, इट वाज रियली कमेंडेबल। आई थिंक एक चीज़ और बात करनी पड़ेगी, जो हमारे डेस्पी इंग्लिश एसपी बात कर रहे थे कि ये जो दोनों टीम्स हैं स्पेशली लोअर ब्रैकेट्स के अंदर आने के बाद दे हैव बीन एनेबल्ड सो मच और बहुत ही अच्छा गेम प्ले खेल रहे हैं। दे प्लेइंग एज इफ देयर लिटरल लाइव्स डिपेंड अपॉन इट एंड वैसे ही खेलना पड़ेगा। बट युरागी का यहाँ पे शट डाउन होना एक अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है।
बट यस जो खराब शुरुआत हुई थी थोड़ी सी टीम ओजी की, उन्होंने काफ़ी अच्छी रिकवरी करी है, क्योंकि मीके को यू कैन नॉट लेट हिम वॉक ऑफ विद दैट फ्री फार्म यू हैव। एंड शैडो डीमन एक बहुत ही अच्छे पिक यहाँ पे बन जाते हैं। यू गेट दैट, मतलब आप एक बार अपने गोले के अंदर डाल दो काफ़ी टाइम तक, यू कैन कीप देम आउट ऑफ द फाइट। स्पेशली अगर आप लीना को यहाँ पे डाल दे रहे हो, या फिर अगर ड्रो मिल जाते हैं तो उसके बाद जो इल्यूजन्स बनते हैं वो भी काफ़ी अच्छा डैमेज डील करते हैं। बट नॉट जस्ट दैट, एक डिफेंसिव मनूवर की तरफ भी आप यूज़ कर सकते हो अपने ही टीममेट्स के ऊपर। अगर उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कुछ प्रेशर आ रहा है, या फिर यू नो लीना ने स्टन कर दिया, उसके बाद फॉलोअप करना चाह रहे हैं, या कुछ भी हो जाए वैसे, तो शैडो डीमन के पास वो एवेन्यू रहता ही रहता है। मीशा का यहाँ पे लेना लिच के साथ, और वहाँ पे स्लार्क को मेजर डैमेज पड़ना, ये एक अच्छी खबर तो ओजी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बट अभी के लिए फ़िलहाल ओजी ने एक छोटी सी गोल्ड एडवांटेज ले रखी है। एंड इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क आप देखिए, मीके डिस्पाइट गेटिंग टेकन डाउन काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेशरैक जो फार्म उन्होंने लूज़ किया था वापस से गेन कर लिया है बीजीएम ने। एंड वी नो बीजीएम हैज़ ऑल्सो बीन वन ऑफ द अमेजिंग मिड प्लेयर्स। तो दो बढ़िया यूरोपियन मिड्स के बीच में ये एक जंग छिड़ चुकी है। अब बस देखना यही है कि कौन सी टीम यहाँ पे ऊपर जाती है। ये टाइगर तो यहाँ पे नहीं बचने वाले। ट्राई किया फेरी फायर का इस्तेमाल, यहाँ पे बीजीएम आ गए हैं, डैमेज देना चाहेंगे मार्सी को, बट यहाँ पे सपोर्ट आते आते काफ़ी लेट हो जाएगा। मीशा थोड़े से पीछे रह गए, और बीजीएम अभी भी चेस पे हैं। दे वांट टू ट्राई एंड गेट समथिंग डन, और यहाँ पे टूमस्टोन का इस्तेमाल कर दिया है। तो टूमस्टोन एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाता है डील करना उसके अगेंस्ट। बट ये देखिए स्प्लिट अर्थ मिस होता हुआ, और यहाँ पे ओजी को ये रोटेशन का कोई खासा फ़ायदा नहीं हुआ क्रैट। अब ये देखिए ना, अब जो गेम की अभी करंट सिचुएशन ये कहती है कि 4 फिनिशर्स यहाँ पर ऑलरेडी लिक्विड के पास है। माटुम्बा ने मल्टी शॉट्स मारकर लेन को थोड़ा सा पुश करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट अगर यहाँ पर अमार सारे क्रीप डिनाई कर देते हैं, देन जो क्रीप वो डिनाई कर रहे हैं वो क्रीप डबल गोल्ड देता है। एक और अटैक विल बी इनफ, वो उस क्रीप को नहीं जाने दे सकते। जाना तो बिल्कुल देना नहीं चाहते, बट आप देखिए डायरेक्टली एक वैनगार्ड के लिए रश किया है, हैजंट ऑप्टेड फॉर द बूट्स आल्सो। अब यहाँ पे बीजीएम उन्हीं के जंगल में बैठे फार्म कर रहे हैं। अब फिलहाल के लिए यहाँ पे जाए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यूरागी के ऊपर, फिर से लेन में उनको अकेला क्या छोड़ा था, और पैंगो ने इसका बखूबी फ़ायदा भी उठाया, और अकेले ही टीम के कैरी ओजी के यूरागी को वापस भेज दिया फाउंटेन की तरफ। अभी के लिए मामला थोड़ा सा संगीन हो चुका है, क्योंकि ड्रो को फार्म अच्छा खासा मिल रहा था, या फिर मैं गलत हूँ, क्योंकि वो उनकी अच्छी लेनिंग नहीं चल रही है बिल्कुल भी। अभी के लिए देखिए मार्सी कितना ज़्यादा डीप आ चुके हैं, मीशा तो ना बच रहे, मीशा को भी ख़त्म कर दिया गया। लेशरैक आने की कोशिश कर रहे थे, हिस्सेदार होने वाले थे इस फाइट के, बट यहाँ पे सेंटर वॉर रनर का यहाँ पे स्टैम्पीड लगता हुआ थोड़े से रिट्रीट पे नजर आ रहे हैं। जाई देखिए कितना डीप डाइव कर चुके हैं, और टाइगा बेचारे ऊपर वॉर्ड स्पॉट पे जाते ही सूली पे चढ़ गए। अब ये स्लार्क फाइट बैक जरूर करना चाह रहे हैं। पाउंस इन्होंने किया था, बट पाउंस में किसी को नहीं पकड़ पाए। थोड़ी परेशानी की बात तो होगी, बट बीजीएम को ढेर सारा डैमेज यहाँ पे पड़ चुका है। मिकी एंड एवरीवन, जाई ने रोटेट किया, और यहाँ पर ओजी के बैक टू बैक पत्ते गिरते जा रहे हैं। युरागी एक और बार मार गिरा है यहाँ पर, और जो नेटवर्थ है वो लिक्विड के फेवर में फिर से हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले ओजी की थी, ओजी ने से छीन कर अपनी तरफ बढ़ाना मेरे हिसाब से काबिल तारीफ अटैम्प्ट है यहाँ पर। और माटुम्बल मैन ने लेन चेंज कर लिया, बिकॉज टॉप लेन पे एक अलग ही बोलबाला चल रहा है अमार का, और अमार के सामने फार्म करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर नाउ, कि ड्रो के सामने सेंटोर के सामने ड्रो इतनी आसान से कंफर्टेबल नहीं हो सकती है अनटिल एक सपोर्ट पूरे टाइम उनके साथ बैठा हुआ है, तो बात अलग है। तो बात अलग है। तो आई थिंक यहाँ पे ओजी के लिए टू ट्राई एंड मेक अ कमबैक, यहाँ पे लिच को जितना स्टैक कर सकते हैं उतना करना पड़ेगा, और उसका फ़ायदा भी उनको उठाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए पल्स नोवा और डायबोलिक एडिट के साथ जितना फार्म यहाँ पे इकट्ठा कर पाएँ, जो फार्म यहाँ पे मिके ने जो बढ़त बनाई है मिड के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल हो चुका है। एंड एक पॉइंट आई रियली वांट टू सी कि ये जो लीना का बिल्ड रहने वाला है वो किस प्रकार रहेगा। जैसे कल आप बोल रहे थे यू कैन गो विद द डैमेज राइट क्लिक लीना, क्योंकि यहाँ पे ड्रो का भी एक सपोर्ट आ जाता है, एंड दिस ड्रो
we'll have to see what is he up to. फिलहाल के लिए मीशा खींच के ला रहे हैं ज़रूर, बट देखिए इंतज़ार में बैठे हुए थे यहाँ पे टीम लिक्विड के प्लेयर्स, और मीशा तो देखते ही देखते फिनिश हो चुके हैं. अब जो उनकी अगली टारगेट रहने वाले हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी द स्लार्क. यूरागी कितने देर तक अपने अल्टी के चपेट में जिंदा रहेंगे, क्योंकि आप देखिए जो स्नोबॉलिंग चल रहा है यहाँ पे टीम लिक्विड के द्वारा. ये तीसरी बार हो चुका है क्रैट कि स्लार को पिक कर दिया गया. जो पूरा फार्म का जो एडवांटेज यहाँ पे अमार ने दिलाया था कि उनके जो लिक्विड के कैरी मातुम्बा मैन को रोक के सारा कुछ नलिफाई कर दिया. और ड्रो रेंजर का यहाँ पे जिंदा रहना, फाइट्स के हिस्सेदार रहना, यहाँ पे किल्स निकालना, साथ ही साथ फार्म करना, आई थिंक ये मैच धीरे धीरे ओजी के हाथों से जा रहा है. मेरे हिसाब से 3-11 स्कोर है, बट जो फार्म है वो बिल्कुल बराबर टिका हुआ है. 1000 की नेटवर्क ज़्यादा नहीं होती. हमारे के पास वैनगार्ड आ चुका है. स्किल बिल्ड अगर आप बात करेंगे तो स्टॉम्प एंड डबल एज 3 लेवल के हैं. 4 लेवल का कर दिया उन्होंने डबल एज, और स्टॉम्प तो उनका 3 लेवल का हो चुका है. और स्टैम्पीड भी 45 सेकंड के अंदर आ जाएगा. अभी रोशान लेंगे, रोशान लेने के बाद हाँ शायद चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी. रोशान नहीं तो यार उनके बाद ब्लिंक आएगा. ब्लिंक के बाद जितने भी स्क्विशी प्लेयर्स हैं they all have to little go back. बट अभी BGM एंशिएंट्स को मारकर अपने फार्म को कंपनसेट करने की कोशिश कर तो रहे हैं, बट उनके पास अभी मात्र 2000 गोल्ड और फेस आर्केन बूट्स हैं. तो आई थिंक ही शुड गो फॉर द वेरी फर्स्ट आइटम, ही शुड गो फॉर हिज यूल चैप्टर. बट ये क्रिस्टल मेडन काफ़ी स्लार्क का सेट बड़ा प्यारा है. आई थिंक इट्स एम्बलम जो उनके नीचे है. और माटुम्बा मैन ने भी थोड़ा तो प्रोग्रेशन दिखाया है यहाँ पर. और एवरीवन अब देखिए जाई भी जंगल फार्म कर रहे हैं, ड्रो रेंजर बॉटम लेन फार्म कर रहे हैं, मिड के अंदर लीना फार्म कर रही है. तो तीनों कोड्स ने अपना एरिया बांट रखा है जिससे कि वो जो एक डिजायर्ड पॉइंट है उस तक जल्दी पहुंच सके. आई थिंक यहाँ पे टीम लिक्विड की ऑफलेन, दोनों ऑफलेन्स ने अपने लेन्स काफ़ी अच्छे तरीके से जीते ज़रूर हैं. आई मीन अब स्लार्क का वो जो दबाव है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा. फिलहाल के लिए 2-man स्मोक किया गया है, जस्ट एंटिसिपेटिंग कि शायद स्लार्क के ऊपर एक गैंक आए और उसका फ़ायदा यहाँ पे टीम ओजी उठा ले. बट डिसेबल्स के नाम पे you've got quite some good disables. I mean आप इनिशिएट भी कर सकते हो. आई थिंक पूरा इंतज़ार जो रहेगा ओजी का, इट्स गोना बी ऑल अबाउट गेटिंग दैट ब्लिंक ऑन दैट सेंटर. बट एक कॉम्बिनेशन एक और भी आप देख सकते हो कि आप अपने गोला चला देते हो शैडो डीमन के साथ. एक बार वो गोला चलता है उसको स्प्लिट अर्थ के साथ फॉलो अप कर सकते हो. तो इनके पास भी बर्स्ट पोटेंशियल है. इट्स ऑल अबाउट ओजी ट्राइंग टू कंट्रोल दिस फाइट्स एंड मेकिंग इट देयर्स. बट अभी के लिए यहाँ पे टीम लिक्विड दे आर हैविंग अ रियली गुड टाइम इनसाइड दिस गेम. बट नेटवर्क के मामले में आप देखिए किसी हाल में BGM को वो सारे एंशिएंट्स मिलना, ही इज डेफिनेटली कैचिंग अप. एंड ओमार हैज़ टू मेक सम बिग प्लेज ओवर हियर, क्योंकि धीरे धीरे देखिए यहाँ पे BKB भी लीना का लगभग कंप्लीट हो चुका है. तो ये जो अटेम्प्ट रहने वाला है ब्लिंक और स्टन एंड देन जस्ट गो विद दैट डबल एज, वो थोड़ा सा दिक्कत होगा. बट फिर से यहाँ पे एक 4-man स्मोक टीम ओजी का हम लोग को देखने को मिलता हुआ. देखते हैं इसका क्या फ़ायदा उठाते हैं. अभी देखो उन्होंने स्मोक तो कर लिया. एंड व्हाट आई थिंक कि जो गैंग की शुरुआत होगी वो अमार के स्टन से होने वाली है. जैसे वो स्टन करेंगे वहीं पे स्ट्राइक का स्टन आएगा एंड उसके बाद दे विल बी राइटिंग अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. उन्होंने एक प्लेयर को स्पॉट करा, उन्होंने डबल एज लगाया और सी दैट आई डोंट थिंक माटुम्बा को यहाँ पे बचने का मौका मिलेगा. युरागी वेंट इन बट टाइगा को मिली है यहाँ पे माटुम्बा मैन की किल और इट्स अ वेरी बिग किल. वहाँ पे BGM मिड पे पुश कर रहे हैं एंड डायबोलिक एडिट कर वो शायद से टावर को तोड़ भी सकते हैं. बट पीछे मर्सी भी है. अगर वहाँ पे डिनाई हो गया तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा. बट BGM को एक इंटेंशन सी लगी थी कि भाई आई एम बीइंग चेज्ड और somebody is waiting down there. So उस चीज़ से बच के रहेंगे तो बेटर रहता. फ्रॉस्ट एरो 4 लेवल के, 1 लेवल का साइलेंट, 3 लेवल के यहाँ पे मल्टी शॉट है और 1 लेवल इनके अल्टीमेट मार्क्समैनशिप के अंदर. टावर को डिनाई करने की प्रतिक्रिया अभी तक चालू तो नहीं हुई है, बट जाय भी अब पहरादारी कर रहे हैं वहाँ पर और पीछे लीना भी है. तो इस वक्त मिड पुश करना बहुत खतरों का काम होगा. और अगर BGM के अंदर थोड़ा भी मस्तिष्क में अगर सोच स्वीकार होगा तो वो ऐसा नहीं करेगा. जी हाँ, आई डोंट थिंक अभी वो करना चाहेंगे. उन्होंने थोड़ा बहुत प्रेशर अप्लाई किया. उनको जो गैंग जिसका चाहिए था, जो कोर की उनको दरकार थी, वो उनको मिल चुका है. बट युरागी को देखिए यहाँ पे क्या करे. ऑलरेडी यहाँ पे लगुना ब्लेड का इस्तेमाल कर दिया है. कुछ होने से पहले ही सिर्फ कुरियर ही नहीं गया, हत्थे चढ़ गए. युरागी के लिए एक बुरा सपना बन चुका है स्लार्क के साथ. पूरा उनको रोक के रखा है. और यहाँ पे एक पॉज किया गया. ये क्या कुछ हुआ है या फिर ऐसे ही मतलब BM करने के लिए क्या लगता है? टेक्निकल डिफिकल्टी, दोनों टीम के अंदर कोई बीफ नहीं है
तो दोनों देखिए कैसे स्पैम हुआ है। वो तो आपस में इनका चलता रहता है, प्यार है जैसे हमारे बीच में है। अरे आपसे कौन नहीं प्यार करता है भाई, आप इतने अमेजिंग पर्सनालिटी हो। बट चलिए आई मीन 4-12 का स्कोर लाइन अभी के लिए, बट नेटवर्थ एक अलग ही कहानी सुनाता हुआ हमें, क्योंकि यहाँ पे टीम लिक्विड के प्लेयर्स मंजे पड़े हैं यहाँ पे टीम ओजी के मिड के तरफ जाने के लिए। एंड ये जो स्टैक्स भी होते हैं शैडो डीमन के, स्पेशली सपोर्ट्स को, स्क्विशी हीरोज को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करते हैं, क्योंकि एक बार आप स्टैक्स रिलीज़ करते हो डैमेज आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड पता भी नहीं चलता आप कब फिनिश हो गए। बट फिलहाल के लिए टीम ओजी के प्लेयर्स यहाँ पे धीरे धीरे काफ़ी करीब 4 प्लेयर्स यहाँ पे स्टैक अप हो चुके हैं। आई थिंक वक्त आ गया है एक और स्मोक गैंग का, बट उससे पहले अपना जो जंगल है वो सिक्योर करवाना चाहेंगे। बट एट द सेम टाइम आप देखिए कितनी डीप लिक्विड वार्डिंग्स यहाँ पे हुई है, एंड इसी इंफॉर्मेशंस के चलते उन्होंने स्लार के ऊपर इतना बेहतरीन पिक निकाला था। बट एक 4-मैन गैंग फिर से, एंड इनके जो शिकार होने वाले हैं ज़रूर चाहेंगे कि लीना या फिर ड्रो पे अपनी मोहर लगाएं। बट इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एंड यहाँ पे फिर से स्पॉट हो चुके हैं, बट दिस इज अ डिफरेंट टारगेट, इट इज गोना बी मार्सी। एंड यहाँ पे स्टन का फॉलो अप और मार्सी ख़त्म। जाहिर सी बात है अपनी मनचाहा जो पिक था वो तो नहीं मिल पाया, बट चलिए किसी से काम तो चला लेंगे। बट जब से अमार ने गैंग के अंदर आना चालू किया है, थोड़ा मोमेंटम तो ओजी की तरफ आ रहा है। एटलीस्ट दे आर गोइंग फॉर सम इनिशिएटिव, स्किल्स निकाल रहे। से पहले माटू को मारा था, अब उन्होंने यहाँ पे जाके मार्सी को मारा है। और लेशरैक को भी इसी बहाने थोड़ा टाइम मिल गया फार्म करने से, उनका ब्लड स्टोन कंप्लीट हो चुका है। द नेक्स्ट आइटम ही इज गोइंग फॉर इज भीखे भी, सी दैट डैमेज उन्होंने यहाँ पर स्टॉम्प मारा 3 पे, एंड ये देखिए पैंगू को तो उन्होंने डेसिमेट ही कर दिया। इंसेनिया इज लाइकली 1 शॉट अवे, और पल्स नोवा की वजह से वो भी गेम से बाहर हो चुके हैं, और फटाक से लीना ने यहाँ से टीपी करके वो सेफ्टी जोन के अंदर पहुँच गए। बट आई थिंक इट्स टाइम दैट ओजी इज बैक इन बिजनेस, और जो भी वो प्लान कर रहे थे, जितना भी उन्होंने सफ़र किया था, इट्स टाइम टू एंड द मिजरी। जी हाँ, यहाँ पे माटू को फार्म की सख्त दरकार, एंड एंशंट्स के को पिक करके जो भी यहाँ पे जितनी जल्दी अपने कोर आइटम्स ला पाए। बीके भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है इस वक्त, नहीं तो दिक्कतों में फंसने वाले हैं। फिलहाल के लिए लीना मीके काफ़ी अच्छा गेम प्ले चल रहा है। पैंगो ने एक ब्लिंक डैगर उठा लिया, तो pretty much anticipating some initiations from team liquid in the next 5 minutes। जो अगला बड़ा फाइट होगा क्राइड, आई एम प्रीटी श्योर वो होने वाला है रोशान का। एंड एक बार रोशान फाइट हो जाए और उसमें थोड़ा सा पता चलेगा कि इस गेम के जो ड्राइवर सीट में कौन जाता है। देखिए एक फुल 5-मैन स्मोक यहाँ पे डाला गया, बेसिक का बस इंतजार था पैंगो के ब्लिंक का, बट इसको काफ़ी अच्छे तरीके से एंटिसिपेट कर दिया गया है। ओमार घुसते ज़रूर है, बट साइलेंस करके उनके ऊपर अल्टी की भी इस्तेमाल हो जाती है, बट किसी तरीके से शैडो डीमन ने उनको बचा के रखा है अभी के लिए फ़िलहाल। बट जाय ही इज़ डेफिनेटली ऑल ओवर द प्लेस। बीजीएम को देखिए कितना डैमेज पड़ रहा है कि वहाँ पे सस्टेन ही नहीं कर पाए। 2 प्लेयर्स ऑलरेडी ओजी के यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, तीसरे प्लेयर के तरफ जा ही रहे थे, बट स्लार्क और युरागी इनफैक्ट काफ़ी तेज़ निकले, और देखिए ऐसी परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि उनको एक मिडास चाहिए फार्म रिकवरी के लिए, और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मिल जाता हुआ टीम लिक्विड को पहले रोशान का। अब देखिए जिस स्लार का जो इको सेबर है वो किसी भी टाइम ऑन हो सकता है। उन्होंने ऑलरेडी ओगर क्लब खरीद भी लिया है, तो इको सेबर आ गया है। अब युरागी इज अ प्लेयर जो मिडास बनाया, अगर उन्होंने तो उसका फ़ायदा भी उठाएंगे। और मिडास आपको एक सर्टेन एडवांटेज देता है, लेवल भी देता है, आपको एडवांटेज भी देता है गोल्ड के मामले में, सो दैट यू कैन हैव दैट एक्स्ट्रा एडवांटेज ओवर अदर प्लेयर्स। तो अभी उनको पता है कि अर्ली फेज उनके हिसाब से नहीं गया, नेटवर्थ में ज़्यादा फर्क नहीं आया, बल्कि किल डबल्स है। तो आई थिंक उनको इतना सेफ लग रहा होगा कि इस गेम को अभी वो गैम्बल कर सकते हैं, होल्ड करके आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अमार की तरफ से एक अच्छा आइटमाइजेशन, हेवेंस एल्बर्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा अगेंस्ट मे बी ड्रो और लीना, अगर ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट कर रहे हैं तो। वो जो हिसाम रहता है बहुत ही ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। एक बार बीके भी ख़त्म हुआ तो काफ़ी टाइम तक आप शॉट्स नहीं ले सकते। इनफ टाइम फॉर सेंटर एंड इसको टू डील आउट अ लॉट ऑफ डैमेज, बट अभी के लिए यहाँ पे टीम ओजी के
वो प्लेयर्स, ओ ये देखिए शैडो एमुलेट का इस्तेमाल किया बट बहुत ही अच्छे तरीके से उनको दे दबोचा। और मीशा तो यहाँ पे नहीं बच रहे, बस मीशा नहीं और उनके साथ यहाँ पे BZM को भी खत्म किया जाएगा। सर्वनाश यहाँ पे ओजी के कोर का फिर से, और यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी टीम लिक्विड को ये टियर 1 टॉप का उड़ाने में। टियर 1 लिया, इंस्टेंट स्मोक आउट कर गए और अब ढूंढने की कोशिश फिराक में कि अगर स्लार्क मिल जाए तो सोने पे सुहागा। यस इट इज। और ये BZM को देखना पड़ेगा कि वो लीना के साथ अब मैन फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये नई लीना है, ये नए हिंदुस्तान की लीना है, ये बहुत ज़्यादा तेज फिजिकल अटैक करती है। बिकॉज एवरी यूनिट्स वो टच करते हैं अपने स्किल के साथ। इट्स नॉट इजी। बट ये देखो टाइगर का फार्म अलग ही लेवल चल रहा है। 20 मिनट के अंदर एक सपोर्ट के पास ईथर लेंस और ब्लिंक डैगर है, और उन्होंने कोशिश काफ़ी अच्छी करी थी उनको पकड़ने की, बट उन्होंने ब्लिंक कर कर अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में लाए। और ये जो ईथर लेंस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बिकॉज अगर आप किसी को लगू ना मारे, उसको लास्ट मोमेंट पर आप डिस्टर्ब कर दिया, देन इट बिकम्स वेरी अनोइंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले है। बट अमार के पास अगर बात करें, अमार के पास हमारे पे लास्ट टाइम हमने देखा था एक वैनगार्ड, एक ब्लिंक था और एक ब्राउन बूट से लिड ही अपग्रेड कर दिया था उन्होंने। ओके, ही डिड हैव द ट्रैंक्विल, आइडियल चॉइस था हमारे पे। एंड अब ये हाईलाइट में देखते हैं ऐसे क्या हुआ, कितनी परेशानी हुई है। चलिए पहले वाला गैंग है जहाँ पर बहुत सारा डैमेज जहाँ पर पड़ा था, बट इस वक्त देखिए BZM की HP देखना आप, BZM की HP देखिए क्या फिजिकल फटके लीना के आए जा रहे हैं, और पीछे से माटू भी उनको डैमेज दे रहे थे एंड इट वाज इम्पॉसिबल। बेशक BZM को बचाना वाज नॉट अप टू दैट मार्क। ओके, ये डिस्टर्ब किया और इंसेनिया पे अब 2 इल्यूजन उल्टा इनकी चढ़ने वाली है। पार्ट 2 देर में बॉटम का टियर 2 ले लेंगे। OG वर्सेस लिक्विड की जो गेम चल रही है एक अलग ही लेवल पे चल रही है, और माटू ने बिकॉज ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि आफ्टर दिस इंटरनेशनल मे बी ही विल रिटायर, सो इट कैन बी द लास्ट, इट कैन बी हिज लास्ट BO3 का गेम। जी अब लास्ट हो ज़रूर सकता है, बट फिलहाल के लिए बॉक्सी को दे दबोचा। बट अब देखिए ये लेशरा काफ़ी देर तक टैंक तो कर रहे हैं, BKB का इस्तेमाल ऑलरेडी यहाँ पे टीम लिक्विड के मीके ने कर तो दिया है। BZM कितने देर तक अपने आप को जिंदा रख पाएंगे? अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा डैमेज डिश आउट करते हुए मातू हो जाएंगे शिकार। अब यहाँ पे OG इज़ ऑन द चेस एंड राइट नाउ फिर से दे दबोचा है लीना को, तो एक बहुत ही बेहतरीन टीम फाइट में जीत होता हुआ OG का। और ये जो मैच का रुख है वो धीरे धीरे OG के फेवर में टर्न कर गया। एक अच्छी बढ़त मिली थी एजिस लेने के बाद, बट यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 प्लेयर गिरा दिए OG ने। और फिर से पॉज, और I hope this pause is not to ये BMing चल रहा है क्राड, आप जितना जस्टिफाई कर दो। Fixes, this is not भुवनेश्वर इंटरनेशनल, this is international। अरे सब चलता है, भुवनेश्वर हो या सिंगापुर, पड़ोसी है बस। सिंगापुर नहीं होता, सिंगापुर हो या भुवनेश्वर हो, बगल में ही है, एक दूसरे के ज़्यादा दूर नहीं है, 4 घंटे में पहुंच जाओगे। फिक्सेस मेरे हिसाब से हमको थोड़ी देर ना इस गेम को एक अलग नज़रिए से देखना चाहिए कि भाई किस नज़रिए से क्या गलती हो रही है हमारे प्लेयर्स की दोनों तरफ से कि जो ऐसा हो रहा है। बिकॉज इनपुट के अंदर जब इनके पास एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज कैसे? देखिए लेशरैक को कितना कुछ टैंक करवाया। लेशरैक के पास जो लिच का आर्मर था इट वाज टोटली वर्थ इट, और उन्होंने उसके दम पर टैंक भी किया। और माटुम्बा मैन की बात करें, लीना की बात करें, सबको एक एक करके पिक ऑफ करके गेम से किया बाहर। अकेले आई थिंक इट वाज जाय जो बचे थे, और बाकी सबको यहाँ पे पनिश डाउन कर दिया था। आई थिंक नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे फाइट में तारीफ 2 हीरोज की करूँगा, दैट इज ओमार सेंटोर एंड द शैडो डीमन। क्योंकि वहाँ पे आप स्टैक्स देख रहे थे कितने थे ड्रॉ पे, उनको समझ नहीं आया डैमेज कहाँ से पड़ा इतना ज़्यादा। एजिस तो चलो ये निकल गया, उसके बाद जैसे आपने कहा लिच का जो आर्मर था उसने काफ़ी देर तक जिंदा रखा, बट उसके बाद इट वाज जस्ट OG कैपिटलाइजिंग एंड विनिंग द टीम फाइट। अब वापस से नेटवर्थ की लीड यहाँ पे इन्होंने ले ली है। अब स्लार्क को मिल चुका है अपना ओलंपिक जंप, एगन इंसेप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब डिस्टेंस क्लोज इन कर सकते हैं। अब इनिशिएशंस OG के पास बहुत ही अव्वल दर्जे के आ चुके हैं, बट फिलहाल के लिए 11-16 का स्कोर लाइन
और ओजी धीरे धीरे अपनी जो नेटवर्थ की वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। फिलहाल के लिए जाई को कुछ ना कुछ एक जादुई चमत्कार दिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक बेहतरीन प्ले करवाना पड़ेगा, क्योंकि लेशरैक पे भी आ चुका है अपना बीकेबी, ब्लडथॉर्न हो गया, बीकेबी कंप्लीट हो गया, अब फाइट में टिक तो ज़रूर सकते हैं। अब ये देखें ना, नेटवर्थ अभी भी बरकरार है, उन्होंने 5 मैन स्मोक करा एंड दे आर गोइंग टू द डायर एंशिएंट, बट वहाँ पे कोई नहीं मिलने वाला, को जो सारे प्लेयर्स हैं वो होल्ड कर रहे हैं इस वक्त रेडियंट जंगल के अंदर। एंड यहाँ पे स्पॉट करा सेंटोर ने एंड सीधा एक पाउंस मारकर उन्होंने कोशिश तो करी है, बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन देयर। बट वहाँ पे लगूना मारकर जिस प्लेयर को मारा था, BGM इज ट्राइंग टू एस्केप देयर, उन्होंने BKB मारकर अपने आप को TP करके एक नई जगह पे ले गए, बट दैट शॉर्ट बकल एंड द डैमेज वाज इनफ टू टेक डाउन BGM बिफोर द TP। ये बड़ा टू एंड फ्रो गेम चला है। थोड़ी देर पहले अभी OG ने ऑलमोस्ट सारे प्लेयर लिक्विड के मार देते, बट अब फिर से लिक्विड ने 2 बड़े प्लेयरों को मार दिया, दैट इज मीशा एंड BGM के लिए तो ये गेम एक नाइटमेयर हो चुका है। BGM जितनी कोशिश करें, फार्म करें, उनका ब्लड स्टोन और सब कुछ वो सब धरे का धरा रह जाता है, बिकॉज लगूना वो खा रहे हैं, स्वॉच बकल वो खा रहे हैं, एंड एवरीवन इज लिटरली मेकिंग श्योर कि BGM गेम में जिंदा बच ना पाए। क्योंकि हमको पता है कि एक लेशरैक अगर जिंदा रहेगा तो कितना ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। फिर से फाइट की रीइनिशिएशन, यहाँ पे स्टन करके डबल एज करने की कोशिश, उसके अंदर यहाँ पे शैडो बॉल के डाल तो रखा ज़रूर था, बट अमार बहुत ज़्यादा डैमेज फिलहाल के लिए टैंक कर रहे हैं। वापस से रीइनिशिएशन होने वाला है, युरागी अपने अल्टी फॉर्म में मौजूद अपने आप को थोड़ा सा हील करना चाह रहे हैं, बट माटू का यहाँ पे आता हुआ स्प्लिट एरोज और थोड़ी देर के लिए कीपिंग द प्लेयर्स ऑफ टीम ओजी एट बे। ये मामला, ये मैच काफ़ी संगीन हो चुका है, काफ़ी पर्सनल हो चुका है। यूरोप की 2 सबसे बड़ी टीम्स के बीच में ये स्टैंड ऑफ और एलिमिनेशन एंड सर्वाइवल इज़ ऑन द लाइन। फिलहाल के लिए वापस से जो सुई है, जो नेटवर्थ लीड की, ये अभी इस बार थोड़ा सा फेवर कर रहा है टीम लिक्विड को, ज़्यादा नहीं है। ऑल टीम ओजी नीड इज़ अ वेरी गुड फाइट। फिर से यहाँ पे किसी का भी हो जा रहा है, जो लेन ले रहा है उसका गेम हो रहा है। फिलहाल के लिए थोड़ी सी चुप्पी इस माहौल के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि अगर इनिशिएशन एक बढ़िया सा हमारे अपने टीम पे को दिला पाएँ। फिलहाल के लिए युरागी आराम से बैठ के डायर के जंगल में फार्म कर रहे हैं। अपना जंगल सिक्योर नहीं तो चलिए दुश्मन के जंगल में जाके फार्म करते हैं। और उन्होंने अपना एक्स भी कंप्लीट कर लिया है, इको सेबर भी कंप्लीट कर लिया है, और 3-4 आइटम चाहिए अभी टीम ओजी को स्लैक के ऊपर। फिलहाल के लिए टॉप काफ़ी ज़्यादा पुश हो गया था, बट अभी भी प्लेयर्स मौजूद। और ये देखिए यहाँ पे स्पॉट आउट भी कर दिया है, और यहाँ पे भागने का कोई मौका नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बट यहाँ पे फाइट का इनिशिएशन भी हो गया है, और इस बार अमार को पड़ता हुआ ये लगूना ब्लेड बैक ऑफ तो कर रही है टीम ओजी, बट अभी तक किसी का नुकसान ऐसा नहीं हुआ है कि बोल सकते कि हाँ ये प्लेयर का भी ख़त्म है। बट फिलहाल सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 प्लेयर्स डाउन हो गए, लेच और उनके शैडो डीमन। सो 2 सपोर्ट्स गए हैं, और यहाँ पे टीम लिक्विड के प्लेयर्स थोड़ी देर में देखना चाहेंगे कि रोशान कब तक आ जाता है। फिलहाल के लिए ये वो फाइट था जहाँ पे लगूना ब्लेड को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने टैंक तो किया था, प्लस यहाँ पे इस समय ओजी को फाइट्स इनिशिएट करना पड़ेगा किसी भी हाल में। दे कांट जस्ट लेट लिक्विड रन अवे विद कंट्रोलिंग द फाइट्स अराउंड है। रोशान यहाँ पे स्पॉन हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज रोशान को पड़ रहा है। एंड टीम ओजी देखिए यहाँ पे स्लैक ने पाउंड जरूर किया, फाइट इनिशिएशन हो चुकी है, अल्ट मार के वापस से पाउंस करके निकलना चाहेंगे, बट यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे स्पेल्स का इस्तेमाल कर दिया गया। स्लार तो यहाँ से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट फिर किसी भी हाल में फिर से बचे तो हैं। बट सेम हम BGM के लिए बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे। लेशरैक को डाउन कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे अमार भी फिनिश हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि टीम लिक्विड को सिर्फ एजिस नहीं मिला, बल्कि ट्रेड ऑफ स्वरूप 2 कोर्स मिल गए हैं। एंड ये एक चिंताजनक विषय है। अब टीम लिक्विड के प्लेयर्स ने यहाँ पे पॉज किया है। क्रैट
ये क्या हो रहा है? ये पॉज मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये रैंडम। ये सिर्फ गैंग्स के बाद हो रहा है, ऐसा मत बोलिए कि उनका गैंग के बाद कीबोर्ड खराब हो जाता है या माउस प्रॉब्लम हो जाता है। बट ये जो स्लार्क का ओवर कमिटमेंट था, ये जो कोशिश थी कि हाँ शायद मैं एजिस चुरा पाऊँ चुपचाप से, चोरी चोरी चुपके चुपके, ये तो नहीं हुआ। ये जो कोशिश थी वहीं की धरी रह गई और आखिरी में एवरीवन वाज पनिश। यहाँ पे सेंटोर पिक ऑफ हो गए, बीजेम पिक ऑफ हो गए एंड मिकी ने दिखाया, मिकी के चेहरे पे एक हल्का सा मुस्कान आया कि यस इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, बट आई थिंक दे हैविंग सम काइंड ऑफ इश्यूज देयर। या तो टेक्निकल कुछ तो हुआ है, टीम का कोई कोऑर्डिनेशन कुछ तो बाग होगा। ये मुस्कुराहट का राज। आप जैसे डिफेंड कर रहे हो दोनों टीम्स को, ये वैसा नहीं है मामला। मतलब आप कभी एक अलग दृष्टिकोण से देखिए कि शायद एक दूसरे के मजे ले रहे हो। एक फाइट ओजी जीतती है वो पॉज कर जाते हैं, एक फाइट लिक्विड जीतती है वो पॉज कर जाते हैं, बट फिलहाल पॉज से आगे बढ़े। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिच का जो आर्मर ये जो डालते हैं सेकंड स्पेल, इससे 60% तक का फिजिकल डैमेज रिडक्शन मिलता है। सोच सकते हैं आप, मतलब क्योंकि जब ड्रो और लीना जैसे राइट क्लिकर्स अभी आपके सामने हो और 60% आप ऐसे डैमेज खा जा रहे हो, तो मतलब एक सब्सटैंशियल अमाउंट तो हो ही जाता है। और इसका फ़ायदा यहाँ पे टीम ओजी को उठाना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम बाय करना पड़ेगा, युरागी को फाइट्स में और ज़िंदा रहना पड़ेगा और बीजीएम को कुछ बहुत ही बेहतरीन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे शैडो डीमन इनफैक्ट टीपी आउट कर रहे थे बट ही डिसाइडेड अगेंस्ट इट। अभी तो मीके की जो फार्म है वो बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। उनके एक्सपी भी देखिए, जीपीएम भी देखिए, सब कुछ अव्वल दर्जे पे। सो ये लीना धीरे धीरे काफ़ी फैट होते हुए नज़र आ रही है फिलहाल के लिए। ओजी के अमार कुछ इतना कर पा रहे कर रहे हैं, बट यहाँ पे सेंटर वॉर रनर ने ऑलरेडी अपने लिए वो हेवन साल्बर्ट बना लिया है, तो थोड़ा सा तो जवाब मिलने वाला है यहाँ पे। होपफुली माटू इसको एंटिसिपेट कर रहे होंगे क्योंकि अब उनका पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा अभी के लिए। स्लार्क ने तो चलिए सेप्टर शार्ड्स दोनों ही बना लिए हैं। सर्वाइबिलिटी रहेगी एंड जी हाँ, शैडो डीमन का भी एक्सेप्टर कंप्लीट हो गया है। ओमार ट्राई कर रहे हैं जितना ज़्यादा जूक कर पाए, कितना टैंक कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई प्रकार का सपोर्ट नहीं है टीम ओजी के लिए। और इस समय देखना यही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, यहाँ पे टीम ओजी इस मैच के अंदर कमबैक करती है तो करते कैसे हैं, क्योंकि धीरे धीरे लिक्विड अपनी जो लीड की तालिका है वो और ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। ओजी के प्लेयर्स इन द मीनवाइल बेबस लाचार इंतज़ार कर रहे हैं वो एक अच्छे फाइट का। अगर वो मिल जाता है चीज़ें शायद उनके लिए अच्छी हो सकती हैं। पर नेटवर्क में अभी भी फ़र्क नहीं दिख रहा फिक्सर, मतलब 4-5 हज़ार इज स्टिल मैनेजेबल। बट अब ये देखिए, अभी यहाँ पर शैडो ऑफ द डांस मारकर अगर आप अटैक करें तो इसका मतलब आपके पास कौन सा सेल है जो आपको वापस बचा पाएगा। बट दिस लीना इज़ वेरी वेरी फैट। बट टाइगर को यहाँ पे उन्होंने बर्स्ट डाउन कर दिया है और उन्होंने सीधा ग्लिफ ऑफ फोर्टिफिकेशन यूज़ करके डायर्स को फॉल बैक करने पे करा है मजबूर। एंड ये ड्रो रेंजर को काफ़ी दूर से टावर को अटैक दे रही है, इसको रोकना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। शायद हमारी जाकर अब स्टन करेंगे और करेंगे कुछ तभी जाके हो पाएगा। दैट 4 स्टाफ एंड मल्टी शॉट एंड एवरीवन इज साइलेंस एंड इसके बाद एक एक करके सारे प्लेयर यहाँ पे गायब होते हुए देखेंगे। और बीजीएम तो नहीं, स्लार्क डेड। आई थिंक जीजी कॉल होने का टाइम आ चुका है। जी हाँ, जीजी कॉल होने का टाइम तो आ गया, क्योंकि आप देखिए कोई भी ओजी कोर्स के पास वो जो इम्पोर्टेंट बीके भी चाहिए इस फाइट के अंदर सस्टेन करने के लिए वो था ही नहीं। ये टियर 3 तो गया, उसके साथ ये रैक्स तो जा ही रहा है। जो अगला मेन बड़ा फाइट देखने को मिलेगा विल बी दैट नेक्स्ट रोशान फाइट, जहाँ पे आई थिंक लिक्विड एक बहुत ही अच्छे ड्राइवर सीट पे आ गई है। हरिकेन बाइक भी बना दिया। अगर सेंटर वॉरनर लीना के थोड़े भी करीब आते हैं तो अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस आउट कर जाएंगे।
और कुछ और फाइनल फटके मिली बैरक्स तोड़ दिए। इसके बाद एक साइड के जो बैरक्स है वो कंप्लीट है। लिक्विड के पास एडवांटेज अभी भी 12-13 सेकंड बचे हैं पूरी एजेस को अभी कंप्लीट होने में। बट ये क्या हो रहा है यहाँ पर, कितना डैमेज, हाइपोथर्मिया, मतलब इसका मतलब ड्रो रेंजर ने यहाँ पर शार्ट दे रखा है एंड इट्स नॉट लुकिंग ईजी फॉर एनीवन। और देखिए कितना डैमेज, वन मोर शॉट एंड शील्ड क्रैश मारा और एक और मार्क्समैनशिप का फटका पड़ा एंड ही इज आउट। सेंटोर मर चुके हैं, बीजीएम मर चुके हैं और अभी जो स्लार्क है वो अभी तक स्पॉन भी नहीं हुए थे। अब एक एक करके जाना आई डोंट अंडरस्टैंड। और इसका अच्छा खासा फायदा उठा रहे मिकी एंड अटैक स्पीड देखिए, अटैक स्पीड इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। बिकॉज अगर आपकी फर्स्ट के 10 क्रीप को लगी है देन आपके अटैक स्पीड मिनिमम टू मिनिमम 0.25 जा सकती है। इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर आपको 4 से 5 अटैक, ये मशीन गन जैसे डैमेज डिश आउट कर रहे हैं इस समय। और उसके बाद जब ड्रो रेंजर का ऑरा भी मिल जाता है तो वो और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है, काफ़ी सहायता होती है। बट फिलहाल के लिए बाउंस करने का प्रयास यहाँ पे ड्रो रेंजर के ऊपर बीके भी इन्होंने चला दिया, अभी के लिए जिंदा भी हैं। युरागी के पास कोई डैमेज आउटपुट सोर्स है ही नहीं। अब जीजी भी कॉल आउट हो गया है, अब कीजिए पॉज, अब कीजिए पॉज। बट उससे पहले ही विक्ट्री जाता हुआ टीम लिक्विड के नाम। एक फर्स्ट गेम आसानी से इन्होंने विजय प्राप्त किया। और जैसा हमारे पैनलिस्ट ने बोला था कि टीम लिक्विड का ड्राफ्ट काफ़ी बेहतरीन नज़र आता हुआ। और ये देखिए चेहरे पे वो हल्की सी मुस्कुराहट। और ओजी के प्लेयर्स शर्म के मारे चुपचाप बैक स्टेज जा रहे हैं, अब कुछ बड़ा सोच के आएंगे। जो पॉजेस दोनों टीम्स ले रही हैं अब बदला तो लेना बनता है बॉस। यहाँ पे जो पॉजेस चल रहे हैं फिक्सेस, वो आई एम 101% श्योर फिक्सेस आपको मसाला चाहिए। अरे स्क्वाड्रन, हेलो स्क्वाड्रन प्रोड्यूसर साहब को अगर मैं पूछूंगा ना वो भी सच बता देंगे कि वो जो पॉजेस हैं वो यहाँ पर वो उनको बीएम नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहे हो। वो बेसिकली वो टेक्निकल इशू होगा तभी जाके पॉजेस ले रहे फिक्सेस। आपको गलत फहमी हुई है। बट गाइज द इंटरनेशनल इज स्टिल लुकिंग वेरी यंग, द फाइट्स आर अमेजिंग, द मैचेस आर अमेजिंग। सब कुछ जो अब हम देख पा रहे हैं बिकॉज दिस इज डे 4 ऑफ मेन इवेंट, लूजर ब्रैकेट डे है। एवरीवन जो आज हारेगा उसको सर्वर से कर देंगे बाहर। सो आई डोंट थिंक कि अभी लिक्विड के लिए बाहर जाने का रास्ता खुला है बिकॉज उन्होंने पहला गेम बहुत सुंदर तरीके से अपने फेवर में कंप्लीट कर लिया है। मैं तो नहीं मान रहा, क्योंकि अगर एक पॉज होता है, कोई कुछ लिखता है यू नो मेरा ये हो गया, मुझे पेशाब आया है, या फिर मुझे मतलब यू नो मेरा माउस नहीं चल रहा, मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा, भूख लगी है, गर्लफ्रेंड का मैसेज आया, कुछ तो लिखते हैं यार। बट इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, बस चल क्या रहे थे इमोट स्पैम्स, A to Z इमोट स्पैम्स चल रहे थे और हर एक गैंग के बाद चल रहे थे। मतलब व्हाट आर द चांसेस ऑफ सच कोइंसिडेंसेस क्रैट। ये जो मैं डिटेक्टिव बन चुका हूँ, जी हाँ, कोनन द डिटेक्टिव। कोनन, आप शर्लॉक? नहीं शेरलॉक वो हैं, वो इजीली नहीं, हमारे शेरलॉक जो हैं वो फिलहाल विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आज तो मतलब लुक्स भी बना रखा है। बट क्वार्टर मैच नंबर 1 लिक्विड ने धो रखा है ओजी को। बट अब ओजी को जवाब देना पड़ेगा, और जवाब भी देना पड़ेगा और बदला भी लेना पड़ेगा, और इस गेम को मैच नंबर 3 तक लेके जाना भी पड़ेगा। बिकॉज दिस इज द डे ऑफ लोअर ब्रैकेट। चाहिए हमारा दूसरा BO3 है। सो अगर कुछ भी गलती होती है किसी की भी टीम की, देन वो उनके इंटरनेशनल की आखिरी गलती होगी। फिर अगले साल ही वो इस जर्नी को कंटिन्यू कर पाएंगे, बिकॉज इस साल का इंटरनेशनल का जर्नी वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ओजी के पास एक और मौका है, अगर गेम 2 के अंदर उन्होंने कम बैक करके गेम 3 में जाते तो ठीक, वरना यहीं से उनको एग्जिट लेना पड़ेगा। जी हाँ, एग्जिट तो लेना पड़ेगा। बट वही बात है, जो नेक्स्ट गेम होने वाला है ओजी हैज़ टू गो कंप्लीट ट्राई हार्ड। आई थिंक ड्राफ्ट के बाद ही हमारे पैनलिस्ट ने बोल दिया था कि लिक्विड की ड्राफ्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओजी फाइट्स में काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे थे। बट इनिशियली जिस तरीके से यहाँ पे युरागी को शट डाउन किया, उनको फोर्स किया कि आप चुपचाप से बीकेबी बनाइए, सबसे बड़ा यू नो जो मेजर आप बोल सकते हो हेल मेरी आप टीम ओजी के लिए था कि उनके प्लेयर्स के पास बीकेबी थे ही नहीं।
फाइट में सस्टेनेबिलिटी थी नहीं। और एक पॉइंट पे जब कोर आइटम्स आ गए यहाँ पे लिक्विड के प्लेयर्स की तरफ, उन्होंने क्या किया, ओमार एक पॉइंट पे वेस्ट हो चुके थे। जो प्लेयर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो गया था, अब उसका डैमेज आउटपुट कुछ बन नहीं रहा था। उसके बाद शैडो डीमन को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते थे, स्टार्टिंग ऑफ द गैंग में उनको पहले फिनिश कर देते थे। और जब भी स्लार्क क्लोज इन करके कुछ डैमेज आउटपुट देना चाह रहे थे, उनको वो मौका तक नहीं मिल रहा था। स्टन आ रहा है, फिर उसके बाद फर्स्ट किल लग रहा है, और लीना और ड्रो का जो चांटा पड़े जा रहा है बारंबार, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था टीम ओजी के लिए वहाँ से रिकवर करने के लिए। और उसके साथ जो पैंगोलियर का नॉयंस आता है, फिर मार्सी भी आ जा रही है, तो इट सॉर्ट ऑफ बिकेम रियली हार्ड। तो टाइम बाय करना चाहिए था, एक छोटी सी विंडो थी यहाँ पे टीम ओजी के पास कि फ़ायदा उठा पाए। बट इट सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड ऑल चेंजिंग फ्रॉम दैट फेल्ड रोशान फाइट, जहाँ पे स्लार्क पाउंस इन कर गए, और उसके बाद एक एक करके ओजी के प्लेयर जा रहे हैं, एक एक करके पिक ऑफ भी हो रहे हैं। मिड गेम पे कोई कंट्रोल नहीं था गेम के ऊपर, और अपना आपा खो बैठे, और उसके चलते मैच भी उनके हाथों से चला गया। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जब लीना और ड्रो जैसे प्लेयर होते हैं, और स्लार्क भी कुछ खास एफर्ट नहीं दिखा पाए। जब पहली बार मैंने बीजीएम को मरते हुए देखा था, वो समझ गया था कि समथिंग इज रॉन्ग। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि थैंक यू फॉर द सर्विसेज आने वाला युरागी का काफी जल्दी। जब भी आप बोलते हो नेक्स्ट गेम युरागी आते हैं, नहीं आते, नहीं आ रहे वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज गेम प्ले होता है उनका। कल तो किया था, आइदर इट्स द मिड बीजीएम, दोनों गेम इन्वोकर वाले जीते, एंड यू आल्सो नो दैट इट वाज बीजीएम। जिस तरीके से उन्होंने अपने इन्वोकर प्लेस दिखाए, अमार का गेम प्ले था, वो युरागी वो जस्ट अ ब्राउनी एक्स्ट्रा एड ऑन थे। प्लस तो आज उनको शाइन करना पड़ेगा, इट्स टाइम टू पे बैक, बिकॉज आज नहीं करा था वो जो कल इन्वोकर का एक एहसान था। वरना थैंक यू फॉर सर्विस, मुझे लगता है वन ऑफ द ओल्ड लेजेंड्स विल बी बैक, द ओजी आ जाएगा। बट यस, हमारे जो एनालिस्ट पैनल पे हमारे जो सीनियर्स है उन पे एक बार चलते हैं, बात करते हैं, क्या बताना चाहते हो आपको। Also providing the other things. He can walk into fights like this, pop Bloodstone, eat CM multis, and it looks like he's taking 0 damage. So now you don't even have to worry about an enemy team exploiting your BKB less timing. And much like Shadow Fiend, a lot of teams have been pairing these like tanky, magic damage dealing frontliners with defensive heroes, so that Lich armor helps keep him alive in the only way he can die, which is burst physical damage. The other hero that I really want to talk about that's still being trending, it's Crystal Maiden. We didn't see it this game because the slightly better supports got in instead, but she's just so effective at winning lanes. AoE nukes is going to apply damage to 2 heroes, secure range creeps, lower attack speed to make sure that trading goes better, and she also really applies really well kill setups, and in those mid-game team fights, she's great at setting up kills and providing really nice roots and other disables to ensure that you get some core pickoffs later on. And a lot of the cores as well, not very mobile, making her more survivable. So those are the 2 heroes that I think are worthy of being added into the Hall of Heroes to join Marcy, because frankly, they have lots of appearances since the main stage. Maybe the group stage, they weren't the most popular, but I mean, maybe it should be like a Bloodstone on a pillar instead of Leshrac, but this is fine too. Leshrac, you count, you have a great item just for you. Nobody else likes it. So yeah, that's it. That's the Hall of Heroes. So 3 heroes, many more to be added. Heroes of the tournament so far. Heroes of the tournament for sure. Thank you very much, Purge. And the one that already was inducted earlier is, of course, the Marcy. And I mean, yeah, they think that's going to get bad next time around. I don't think there's any doubt about it. Boxy knocked it out of the park with that one. And yeah, we're going to find out, of course, what's going to happen in the second game of the series. But before we're going to do that, we are checking in with Slacks and Casey. Yeah, we are continuing our journey through the audience to find as many people as possible. You're being a little creepy about it, though. I don't know if you've noticed that. What are you talking about? I'm not creepy. Am I creepy? From a mile away. I don't know. Yeah. See, he said he doesn't know. Okay, that's not unfortunate, but you know what's not creepy, my friend? Our cool-ass tats. Now, ladies and gentlemen, I found a bit of a celebrity here. Show the boys a holy moly! Straight from Dark Creek Prison. What is your name, sir? Richard. My goodness, that is the biggest, coolest tat I've ever seen. What prompted you to get the Slarky Malarkey? I don't even play Slark, just looks cool, so you know. Well, you're damn right about that, son. It looks cool as hell. Now, that's not the only one, right? We got another one down here. Oh, my God, the Bloodseeker as well. Ladies and gentlemen, a lot of people cosplay. This man's cosplaying every goddamn day. This boy, give it up for him. Real Dota fan. Oh, thank you very much. You know, I actually have a tattoo myself. No. Is that not good? Back to you, back to you, back to you. Take it easy. Come on. Back to you, back to you. The people want to see. No, they do not. Come on. People don't even want to hear. Get out of here.
Okay. Get out of here. Thank you very much, Casey, for preventing eternal trauma, I think, on a lot of people's Could have been a ban as well. I think the channel. We cannot be coming back to you here. Close to a ban with the Slark tattoo, which is top-notch, by the way. That was high quality tattoo for sure. And Slark, we also saw, of course, in the previous game just now, did lose. But we don't get to see Slark in the meta that frequently, so I think a win is a win. You got him on stage. That's as far as it's gonna get for now. Maybe Matumaman is also a very good Slark player. That's how he got known with them. Anybody remember 4 anchors and a sea captain? Oh, that was so yeah, long back ago. in the day. Was that the Finnish stack? The full Finnish stack? It was a lot of Finns. Yes, it was a lot of That Finns was for sure. a play on the 4 friends plus Krilly, right? Yeah. that was the that original. one also rings a bell. But I feel like Slark was not able to, like, do what he's supposed to do in the game, because he was never like this new build on Slark works really well when you get to the point with the Aghanim Scepter, recent changes to Pounce, or you do get your Essence Shift stack instead of doing the damage, and then like you want to poke, you want to go in and out picking up the shard, so you want to reset the fight, but there was never really like a follow-up, because the rest of the team needed to go in, use the BKBs, and you know, just play with the team, and didn't just shoot the way that they needed to play to be able to win that game. And like also having some AoE control as well. Pango does quite a lot, and so does Lina with the LSA. Like they did manage to control the Slark. But not only that, right? In regards to the Slark, he bought a Midas, and that's typically what a lot of Slark players have been doing, and you do see it work out. And the problem with the Midas is that you're going to slow down really hard versus a team like Liquid, who are going to look to exploit those timings. And because you're playing with a Centaur and Shadow Demon, those heroes don't do that much damage, honestly. So when Amar did get the Blink Dagger, there was that one really great fight in the top lane where he set up for 2 kills, and it looked nice, but that was about it for a while, right? Up until the point where Liquid overextended all the way to the bottom of their jungle early on, there weren't really any fights that looked great for them, and everything was just too slow. So I didn't see the innate synergy in that Shadow Demon within the draft, right? I have more of an issue with that than I do with the Slark. Now, we know that OG has got a good support system around them, so when we're talking about potentially coming back, forcing that 3rd game, it's not going to lack on speeches, Jenkins. I think they got that covered. Yeah, well, the unfortunate thing for OG is we have heard from Amar in the past that he does indeed not listen to those speeches, and they're a bunch of bullshit, basically. But, you know, OG, they have a lot of ideas when it comes to drafting and how to, play the game better. I actually think that the Lina plus Drow looked really strong against Leshrac. It's just 2 heroes that you run into on Lesh. You're like, I'm going to run in Bloodstone, and it's like, okay, we'll kill you. You're not even going to Bloodstone off of us. Their range is too long to Bloodstone off of them. That's why Terrorblade is considered the counter to Leshrac to one extent, because before, people thought, oh, I'm just going to pop that, my ulti, run in. But Terrorblade, like, he hits his timing, especially the Scotty timing, where you're unable to get close to him. He just outranges you. And if you have an extra hero like they did, Drow Ranger plus Lina, you just take way too much damage and die. And we can hear in the comms also just yelling, Lesh, Lesh, Lesh. Lesh, 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 and that Lesh died quite harshly. It was, of course, first phase pick coming out from OG. We're going to find out soon what will be the openings for our 2nd game, as we are seeing the teams taking their places back on the stage here at the Suntech Arena. It is a lot that they are playing for. I want to highlight again the friendship that they have. I think that is forgotten at this moment, though, because there's only one thing that counts, and that's the game. They're going to be full focus coming out on this one with, of course, Matsumaman. He is, we're going to see at least 2 more games guaranteed for Matu. So that's always good. We're having Faith Beyond, of course, also in the lower bracket, another player that has the retirement looming. And the longer we can get to see them, the happier we'll be, Effie. I mean, it's just really sad, right? Regardless of which team wins, there's no way we're not going to be upset. I mean, today is just a really brutal day. It is. It is. I mean, we can only take 4 teams with us to finals weekend, and there were 8 teams remaining at the start of the day, so we need to cut it in half. I mean, that's the nature of TI. The teams that you love, the players that you love to follow are going to be, brutally crushed, and they're going to have their spirits broken, and so will you as a fan.
except for the winning team, and nobody knows who that's going to be. Unless you hate 19 teams, you're going to be sad like at least 10 times. That's really, yeah, there's obviously more teams losing than winning. That will always be the case. I would hope so. I would hope so. There's many more teams that lose than win. But I mean, when you think about it, it's really brutal because all of these teams come into this competition with these enormous dreams and these enormous hopes on their shoulders. And they're all feeling that's such a what if. What if it's us this year? What if it's our year? And when it isn't, when you suffer that loss on the main stage, it is so crushing. Absolutely. Because we did have so many underdogs storied throughout the TI history that, you know, even coming in prior to TI where you didn't do like as good as maybe you expected, but in this TI, you're like, you have a mindset that you're going to win the whole thing. Otherwise, you're not going to win it. Yeah, that's the most soul-crushing thing about it is that if you don't believe, you won't be good enough, you won't be confident enough to beat the people that do believe. So that makes it all the more soul-crushing when they lose. That's deep, Jenkins. That's really deep. But speaking of confidence, something we briefly touched up on earlier but didn't really discuss at length was... Well, it is time. Hold that thought, Effie, because we're getting into the draft for the second game of the best of three. Let's get started with that. Liquid versus OG. Game 2. I think the majority will agree that we would love to see a third game between these two teams, as they have been playing some very entertaining Dota, and it would be sad to see either of them. And in this case, OG, of course, exited in a 2-0 against a team they are so familiar with. We know they can do it. It would be soul-crushing if indeed they don't do it. Yeah, she I have a really good point to make here. Okay, go for it. Go ahead. Go ahead, Effie. No, Jenkins, I really want to hear your really good point. Yeah, what I wanted to say is... just kidding. Lacoste, please say the thing. Nothing? Do a joke. Do a joke, Lacoste. I do have to point out, by the way, Marcy is still in the pool. Sorry, Effie, as you were. As you were. And not anymore. Okay. So the thing is, you look at OG, I don't think we've given these young players enough credit yet just for how they've played on this main stage, because you look at OG and this is a 2-time TI winning organization. So you look at it as if it's just a veteran team sitting on the stage, but it isn't. It is not. There are 4 first-time TI players here, and they're all so young, and they all must be so nervous compared to Liquid, who are all veterans. I mean, I really do think that... I'm sorry. What's happening? Look at his stack of papers. Why does he have so much paper? I know it's an OG meme, but does he need that much? Stop putting on camera. It's so distracting. Also, what does he do to the papers? It's not like he's he can't even see airplanes. anything on it. There's some... No. He's for real, though. That's the thing. He's for real. I remember Seb telling me at the major that or actually Amar told me he sleeps for only 4 hours because sleep is a waste of time. And then Seb was like, please tell him to sleep, please. I've been trying to convince him to sleep for 8 hours. He won't do it. This is real. These are actual draft papers. Hey, it's got him to top 8 at TI. Don't make fun of the boy. And he is one of the youngest players here. This is incredibly impressive that he has that much prep to begin with. Yeah, James, I don't see any papers. I don't see any papers on your desk. I'm not making fun of him. He's like an eccentric billionaire type. You know what I mean? That's true. That is very true. He's like just does this crazy things, but he's so good. That's what's funny about this. That's very true. It's like this is a bit, but it's not. This is real. This is his real notes. It's amazing. It is amazing. Good for him. We respect the grind over here. We do. But he should. You should take a note, Jenkins, and do the prep next time. Go ahead, Effie. I don't even know what I wanted to say anymore. You go, I got the Leshrac Tuskar combo. Tuskar hero that we were seeing a lot more. Wow. Okay. Tuskar and Huskar. Yeah, that's an Amar specialty right there. I'm going to see some offlane Huskar today, it looks like. It is an Amar specialty. I gotta talk about this because the start of the tour, the start of the season, the start of Tour 1, everybody's like, OG picked up these youngsters, Misha as a captain. We only saw him as a coach until that point. Taiga joined them and was like, how far can this roster go? And then this Huskar came out for Amar, and he crushes with it. It's one of his best heroes.
He definitely knows this hero to the limits and how to play it. And we see this all the time in these game twos, these potential elimination games. Comfort. That's when the comfort pick comes out. The pick that you've won so many games on. You just ask for it and you go for it. We saw it with the sniper yesterday. We've seen it with Pudge. Now we're going to see it with Huskar. Yeah, we heard Fate Beyond also talking about, this is the potentially last game of the tournament. We better pick our comfort heroes. They did pick Axe for himself. Worked. And it worked really amazing. So this is what OG is doing here. Maybe it's time to get rid of Pudge Jank. It's pure damage against the Huskar, Aghanim Scepter, reducing some healing. They did ban out Shadow Demon and Ancient Apparition, so for now they are protecting this Huskar pick. I'm very excited for this. You know, though, you know what else is good against Huskar? Bit of sniper action. That is true. That is very true. And both Sniper and Pudge, Liquid does like him. Team Liquid. Sometimes at the same time as well. True. And I'm more confident in this Slush Rack on the side of Liquid than when OG do play it, to be honest. And they got Boxy, one of his comfort heroes, the Tusk. We saw how effective he was and his ability to coordinate with his mid laner last game, so I expect to see a lot of the same collapses on mid happening. And depending on how well this Slush Rack does, I think that it could be potentially very easy to just take that mid tower and potentially translate into kicking Huskar out of the triangle. You don't necessarily have to divert your attention, if you are the Tusk and the Lush this game, to invading the jungle early. You can just choose and opt to park that triangle and not give Huskar a game. What I like about Amar and the way he came into the scene is not caring about what he's playing against, because he's gonna first face Huskar and he's gonna get tested. He's gonna have this is good, this is bad matchup, but still he wants to play it. One of the reasons why he's so good, because he knows how to play from behind as well, and he knows the matchup. This man just grinds Dota. I do have to say though, Huskar, also a greedier type of hero. Yeah. He can't play that blink initiator type of role up until he gets items later on, especially Ag Scepter, for a very long time. He needs to sit down farm. He needs a somewhat advantageous lane, and he needs his team to be able to play without him for a while, especially if that lane goes badly. And of course, it's not a Wraith-backed hero. Again, Classic. OG don't have that hero to build the auras for them, so they're going to need to pick some very macro-intensive heroes for the rest of OG. I think Lysium's Invoker yesterday was incredibly impressive. I mean, to this day, I think that was one of the masterclasses of Invoker and how to play on a bigger scale, not just how to click your buttons. Yeah, he had 2 games where his Invoker was just insane, 0 deaths. Yeah, and also, first phasing Huskar does put a lot of pressure on the other team, because whatever you planned to pick, you're definitely not gonna go for it, because there's this X hero on your screen that is screaming, "Oh, we need to counter address it." Yeah. If you had 3 different options of what you want to go for, probably you gotta throw it in a bin and just scratch it and start all over again. But it seems like they're comfortable going for picks that they have already been playing, right? They bring out the Crystal Maiden that they've also played to success. Oh, the Ember comes out. Interesting. So this does play more of a macro game as well, but it is kind of dependent on a lane matchup too. It can't necessarily have a really bad lane or die a few times, and it can't do anything for Huskar in the case that does happen. So OG have to make sure that no gotcha pick comes out here from Liquid. And I really like what Effie was saying too about actually what both of you were saying about the way to deal with Huskar. Okay, so this is great because not only do they counter it in lane, which I think is a place that you can punish the offlane Huskar, it's also something that benefits from this guy being low HP for the entire game. Bloodseeker's going to be constantly hasted. Once he gets that BKB, none of these OG heroes will really deal with him. So that's a perfect pick. Yeah. And also, go ahead. No, go ahead. No, just the early rush that Huskars tend to go for, Huskar teams try to set up for with the armor toggles and whatever, you will get vision of that from the Bloodseeker. So it exposes a lot of the map movements that you try to do there. You also do have decent Roche-taking lineup with yourself. Having a tag team, Crystal Maiden, you know that heroes will have enough mana plus Leshrac. So if you take a fight near Roshan, taking away Aegis from Huskar is kind of a big deal. But to go back to OG's side, they are drafting against this Tuskar. There are potentially rotations. So you have a cookie, you can get through the shards, so you can get a toss back. But a lot of those abilities are movement abilities. I'm not saying that Bloodseeker has, 4 rupture charges, but if someone is ruptured, like Huskar, ain't saving this is not going to save them. This is going to deal a lot of damage to them.
right, so a hero that could stand and fight against the Bloodseeker as a carry. Sniper, he's still in the pool, but I don't know. It's weird. It's a little bit weird with these other heroes that OG has. Like I almost feel like you need a playmaker just because your offlaner is a Huskar. So OG's are greedy. You know, they have these 3 cores that always do get a lot of farm. I think having Tiny plus Snapfire, you can always do something around the map, especially Snapfire, because this hero scales so well, and also Ember Spirit. He is a hero that can easily rotate, so I think you can fit in something greedy in here. The thing about Tiny is that in the past, it felt a lot easier to play this Tiny and get that early blink and get those kills, because the way that you play this hero now is most 4 Tinies just buy the phase boots and they try to fight for the blink dagger. You will never get a lane, and a lot of players now know how to counterplay a Tiny. They know to not get tossed back in the lane. They know how to kite around it. So Tiny's job becomes a lot harder. And they are a little bit dependent on this Tiny's Link Dagger timing too, if they're going to have the 2 supports be the crux of their map movements. Yeah. So I think somehow maybe if these 2 supports can play around mid and try to secure Ember's game, then that could probably be OG's best approach into opening up the map for themselves, because you can't play against, you can't play for this Husker early on, and I don't really think that you can secure this carry matchup. Yeah, definitely. Like Ember, if he's got a good game, then yeah, he can be all of the playmaking that you need. But if OG does want to go for something that's a little bit less greedy for Yuragi, they actually have played him on the Broodmother. They've played Nature's Prophet, so there are options for him that are... SF is still unpicked. But also kind of has a really bad win rate on the main stage. Yeah, but you know, you want some kind of fast-paced sort of carry that will win lane. Sure. I would be very scared for them if they went SF here, honestly. I think there's a lot of ways to get on top of it and punish it early on, especially when you have a Leshrac 2 who can easily move to SF's lane early on, kick him out, and take his tower. And the problem is OG can't secure this pick because Liquid have last pick. They have the last pick offlaner for whatever they go here. Yes, so they need to show. I mean, if they need something that plays a little faster, Monkey King is an option, a hero. The problem is you don't know the lane matchup. And they did ban out Beastmaster, Dead Prophet, because they are not the ones with the last pick, so like Dead Prophet could suit in easily, especially with the Tusk combination, so this one makes a lot of sense and would give even more momentum to Liquid, so liking this last ban from OG quite a lot. Really thinking about this one. I really are. And this one is really rough. Because there are still a lot of Zai's heroes open in the pool. Obviously, the key one and Enigma being taken out and the Beastmaster, but they could still opt to go for the Tidehunter route. Nature's Prophet coming out. We've seen Yuragi played against RNG in the group stages, and they did come out on top for that one. I think this is probably the best thing that they could have done, because this is a really strong laner. It's going to be hard for them to give this hero or give the last pick hero on Liquid a good lane versus Nature's Prophet. Very few heroes can say that they have that. It can also join in the fights early on. We were talking about how OG needs to enable this Huskar to sit back in the triangle and farm, so they need a more active style of carry that can just teleport around the map, take towers, play with this Tiny if he does rotate to the mid lane. It's fast-paced. So Go go ahead. ahead. No. Sorry. Primal Beast is still in the pool, but I'm thinking about maybe Tidehunter. Something, I don't think you need to match up the team fight. It's cooldown dependent. On the other side, these heroes can fight all the time from OG, but I feel like maybe just pick it for the lane, because you're playing with Tuskar. A lot of these ranged offlaners have been banned. Some heroes that Zai did play don't really fit into what they have right now. Or a ranged hero like Viper, potentially. I see a lot of smiles on this camera, by the way. There's some good vibes being spread around on the team. Drum roll. Yesterday, they said they wait as long as possible. They have their pick figured out already. And they like to troll Matsu, so they like to wait as long as possible with the reserve time. I think potentially they could go for some ranged offlaner with Tusk, maybe a Viper. They go for the Brood. Ooh, that's an unexpected one. Into Ember, which cleaves through all of the spiders and sleight of fist for about 30 seconds straight. And the snap with the kisses and the Tiny, there's a lot of wave clear for the spiders. Good in lane.
But Brood can do a lot in terms of moving around the map, like especially connecting her webs from whichever lane side of the map she decides to take over to Roshan. Well, let's find out how it's going to get played out. We're heading over to Slacks first for an interview with the coach of OG. It's Chavash. Thank you so much, Sheever. I am here with Chavash, of course. Big emphasis on the laning phase in this draft. It looks like that Huskar came out, but they answered with the Bloodseeker. Are you nervous at all by that counter pick? Do you think that that might cause some issues? No, only bro to make me nervous. All right, does it make you nervous at all? Just a bit. Okay, just a little bit. Now, I was sitting right next to you when you saw that Broodmother last pick. Typically, coaches will go, like, oh no, it's Broodmother. But you, Stone Cold Giga Chad, are you worried in any way about that Broodmother? A bit. Okay, a little bit. All right, well, ladies and gentlemen, let's see if OG can take this one out and get us to our end game. Ladies and gentlemen, please welcome our casters. Thank you so much, Slacks. We do get into it. Game number 2 here between Liquid and OG. OG have brought out something different. What is up, guys? पूरी की पूरी Dota 2 The International हिंदी डेस्क आज एक ही साइड बैठी है. उस काउच को हमने डिसऑन कर दिया क्योंकि वहाँ पे ठंडी लगती है हमें. बेसिकली ऐसा नहीं है, ठंडी नहीं लगती. वहाँ पे ये हमारी वाली साइड है. ओ ये ओजी की साइड है. जी हाँ. ये कब डिसाइड हुआ? क्योंकि आपने रेड बुल पकड़ा है और हम इस साइड बैठे हैं और क्रैड भी आ चुके हैं. थोड़े बहुत लिक्विड के सपोर्टर थे, बट जिस तरीके से उन्होंने कुटाई देख ली ओजी की, बोले कि चलो मुझे गेम नंबर 3 चाहिए. तो जैसे हमने कल तंद्रा का कमबैक कराया था, क्या आज हम ओजी का करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं. नहीं. So should we start? No. Why not? No. Why do you not want OG to win? It's too early. Mid game में करेंगे सर हम. We need to get wasted first. अपना buff हम mid game में देंगे. ये सिर्फ हम तभी करते हैं जब हमारे अंदर वो थकान आ जाती है. 13 घंटे बाद. हाँ, 13 घंटे बाद जब आखिरी गेम आएगा, ऐसे लग रहा होगा कि जान जा रही हो, तब वो एंथम सॉन्ग चलेगा. फिर जाके हम चलेंगे तो ओजी चलेगा, या फिर अगर नहीं चल पाए तो जैसे क्रैट ने कहा, थैंक यू फॉर सर्विसेज. क्योंकि इस बार जितने भी टकले हो रहे हैं किसी के फेवर में तो जा नहीं रहा. प्लीज टकला ना बोले किसी को. क्रैट ने सुबह किसी को डांट लगाई थी. किसको डांट लगवाई थी क्रैट? भाई क्रैट ने लगाई थी. क्रैट आप क्यों टकले नहीं होते? हे आपको भगवान, सूट करेगा. आप आजकल बोल बॉडी बना रहे हो, मतलब आप पूरा जॉनी सिंस बन जाओगे. विन डीजल. फिर आप भी फैमिली बोला करिए. हम तो हैं ही ऑलरेडी फैमिली. अगर क्रैट विन डीजल हुए तो पॉल वॉकर कौन बनेगा? मैं. ठीक है, आइए मैं आपको मारता हूँ. नहीं, आप मुझसे रेसिंग. सूजवा पॉल वॉकर है, पानी में भिगो दिया था रात भर. ये भी जिम जा रहे हैं क्रैट. बाय द वे गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता है, ऑलराइट, पहले टूर्नामेंट का अपडेट दे दूं. लोअर ब्रैकेट के आज एलिमिनेशंस मैचेस है. टीम लिक्विड वर्सेस ओजी इज द गेम दैट्स हैपनिंग राइट नाउ. टीम लिक्विड इस BO3 सीरीज में 1-0 से अभी लीड करते हुए नजर आ रही है. और फिलहाल देखना ये होगा कि ओजी ये गेम जीत के सर्वाइव करके इस सीरीज को तीसरे मैच तक लेकर जाएगी, या फिर यहीं पे ओजी का TI रन खत्म हो जाएगा. और अगर ओजी बाहर जाती है, 2 टाइम बैक टू बैक विनर्स जो हैं वो बाहर जाएंगे. डिफेंडिंग चैंपियन नहीं है, बट 2 बार बैक टू बैक जीता है. ये टैग हमेशा ओजी के साथ जुड़ा रहेगा. और दूसरा अपडेट ये है कि आज एक और कॉम्पिटिशन है. There's a race tonight. I'm not talking about Formula 1. I'm talking about a swimming race happening between official Crat and Fixes. Daddy Fixes. आज जो क्रैट की अवस्था होगी, और वो 5 दिन तक जिम नहीं जा पाएंगे शर्म के नाम पे. स्विमिंग का जिम क्योंकि से वो जो झील में तैराकी लगाते हैं, शायद वो कभी कॉम्पिटिटिव पूल के अंदर आए नहीं है. क्योंकि उधर का स्टाइल, उधर का रुतबा, सब कुछ अलग होता है. रुतबे की बात कर रहे हैं आप. गुड़गांव में अगर आपने डाइव मारी और मैं पीछे से आपके पैर पकड़ लूं तो आप कैसे तैरेंगे? अरे बिना पैर के भी स्विमिंग कर सकते हैं आप. समझ रहे हैं जॉनी? एक स्टाइल होता है जिसमें आपको पैरों को ऐसे रखना पड़ता है और उसको एक समान ऐसे 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 करके जाना पड़ता है. वो जब बिगिनर्स होते हैं, आपका एक नहीं 2 पैर पकड़ूंगा फिक्सेस. और 2 पैर पकड़ोगे तो वो अनफेयर हो जाएगा. एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट. नहीं जॉनी, नहीं. देखिए सपोर्ट भी तो यहाँ पे टाइनी यही तो करने की कोशिश कर रहा है. अंशदाई ने भी वही कोशिश करने की मतलब प्रयास थी. ये टाइनी जो है टाइगर के, ये भी तो जाके सामने वाले और जो इनके ऑपोजिट लेनर्स हैं उनके पैर ही पकड़ रहे हैं एक तरह से. इनको पैर नहीं पकड़ रहे, इनके पैरों तले जो जमीन है वो खिसका दे रहे. एक हिट प्लीज. चलिए, अब तो ये ब्लड सीकर मतलब पागल हो गए होंगे.
कि जो इनको स्पीड मिला होगा अभी इसका कैसे फ़ायदा उठाएं। बट फिलहाल के लिए काफ़ी अच्छी लेनिंग चलती हुई और ये देखिए टाइनी का हो गया सत्यानाश। इंसेनिया को मिलता हुआ ये पहला फर्स्ट ब्लड और अमार अपने कंफर्ट पे हस्कार पे खेल रहे हैं। उन्होंने बोल दिया यार मैं अगर बाहर जा ही रहा हूँ तो हंसकर खेल के क्यों ना जाऊँ। अब कोई ख्वाहिश की गुंजाइश बस छूटनी नहीं चाहिए, सब मिल जाए। और यहाँ पे युरागी का एक बहुत ही कंफर्ट पिक भी है इनका। जैसे हमारे डेस्क ने बोला था लास्ट टाइम पिछली बार आरएनजी के अगेंस्ट खेले थे एनपी और जीता था। बट यहाँ पे क्रैट आपकी एक्सपर्टीज़ की हमें सख्त ज़रूरत है। आप बताइए ये जो ड्राफ्ट है ओजी का, इसके पीछे का जो तात्पर्य है ये क्या हो सकता है? ग्लोबल प्रेजेंस अच्छी खासी है और एम्बर स्पिरिट की बात करें देन आफ्टर द सेप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है। बट युरागी को मारना दिस इज नॉट लुकिंग गुड। और जिस स्पीड से जा रहे से पहले भी एरिया को फर्स्ट ब्लड मिल चुका है, उसके बाद फिर युरागी को मारा है। ओजी शुड रियलाइज दैट दे डोंट हैव मच चांसेस। दे लूज दिस गेम दे विल बी आउट ऑफ द गेम, आउट ऑफ द टूर्नामेंट, आउट ऑफ द गेम। और युरागी है ना, मैंने कुछ बहुत साथ देखा है कि नेचर प्रॉफिट इज अ प्लेयर जो मतलब बहुत जल्दी स्प्लिट पुश के अंदर वो एक आउटपुट दिखा सकता है। एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव गेम है। लेट्स सी क्या प्रोजेक्ट कॉज अनफॉर्चुनेटली जब एंटिटी वर्सेस आरएनजी चल रहा था उस टाइम पे आप दोनों थे अकेले, आप दोनों ने जो निकाला था इतना बड़ा मैच। आई विश मैंने देखा होता तो मैं कंपेयर कर पाता। बट अभी अमार इज प्लेइंग हस्कर। हस्कर के पास आपको यू नो द डील, बिकॉज उनके पास मैजिक रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है जैसे जैसे उनकी एचपी कम होती है, अटैक स्पीड बढ़ जाती है। और अब उनके सामने है ब्लड सीकर। ब्लड सीकर एक ओनली रीज़न जिसकी वजह से वो जीत सकते हैं अगर उनकी लास्ट हिटिंग ऑन पॉइंट रहेगी तो। आई थिंक जीत जाएंगे विराट, बिकॉज जैसा आप वो गेम की बात कर रहे हैं एंटिटी वर्सेस आरएनजी, लेट गेम तक ले जाना उतना आसान नहीं था उस टाइम पे एंटिटी के लिए। आरएनजी ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी थी गेम को क्लोज आउट करने की। एंड प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि जब भी टीम फाइट होती थी आरएनजी जीतती थी तो एंटिटी बाय बैक करके आ जाती थी। अब एंटिटी फाइट जीत रही है, आरएनजी बाय बैक करके आ रही है और उसके बाद दोनों में से कोई दूसरी फाइट फोर्स नहीं करता था फॉर एटलीस्ट अनदर 10 मिनट्स। फिर वो रीसेट करने लग जाते थे दोनों की दोनों टीम्स। यहाँ पे आई डोंट थिंक कोई करने वाला है। ये दोनों की दोनों टीम्स बहुत ज़्यादा उतावली हो जाती हैं बीच में। याद है उसके ऊपर भी मतलब इस पे ऐड ऑन भी करना चाहूँगा जॉनी, एक प्लेयर कोई भी टीम का अगर डाउन हो जाता है सारे पीछे हट जाते थे। तो जो लेट एंड गेम फेज पे हम आ गए थे, सब एक प्लेयर डाउन मतलब सब पीछे बाय बैक कर देते थे, सब बैक। और ऐसे ही वो सिलसिला चलता गया। बट फिलहाल के लिए ये सिलसिला हस्कर का यहीं पे रुक रहा है क्योंकि यहाँ पे युरागी हो रहे शट डाउन, अमार डीएफ वो भी हो चुके हैं शट डाउन। अब मतलब ऐसा कहना क्या ठीक रहेगा कि ओजी भी हो रही है पूरी तरीके से शट डाउन। क्या बात करी आपने, मेरे तो आपका भी मन करता है घूसा मार दो आपने। बट ठीक है, आप फिक्सेस, आप बड़े आदमी हैं। बट यस यहाँ पर टस्क, अब ये जो टस्क है ना, ये अकेला टस्क के पास अगर थोड़े से आइटम आ जाए देन प्लेयर्स लाइक नेचर प्रॉफिट, एम्बर, इन सबको अगर एक वॉरिस पंच मर जाए तो उतर सकते हैं। मतलब जितने भी इनके पास होगी ना हवाबाजी सब खत्म हो जाएगी अगर। बट यहाँ पे मिशा इज ट्राइंग टू चेज दिस, नॉर्मल फिजिकल अटैक कर रहे हैं। अगर एक आधा लिल श्रेडर या स्कैटर ब्लास्ट मार देंगे तो फर्क पड़ सकता है। बट अमार ने धीरे धीरे कर लेन के अंदर एग्रेशन तो दिखा रहे हैं, उनकी क्लैरिटी कैंसिल करी। टाइगा भी उनके साथ में ही है। टाइगा को फाइनली उनके लेवल का कोई प्लेयर दिया है, वरना उनको बहुत पैसिव अप्रोच प्लेयर दिलाए जा रहे थे जैसे ओरेकल एंड इससे पहले शैडो डीमन। अब टाइनी से शायद से ये प्लेयर मुझे कुछ करिश्मे करते हुए दिखाएगा और अच्छा लगेगा देखने में। बट ये ब्लड सीकर का आर्काना बनाते हुए हमार बट जो भी हो यहाँ पे ओजी 3 में से 2 लेन्स तो हार चुकी है ऑलरेडी इस समय क्रैट। एंड ये एक चिंताजनक विषय होने वाला है और जल्द से जल्द इनको अपने मिड को रोटेट करवाना पड़ेगा। दे विल हैव टू स्टार्ट विनिंग सम गैंग्स, नहीं तो चीज़ें बद से बदतर हो सकती हैं। एंड अभी के लिए फ़िलहाल जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, 4-0 की स्कोर लाइन और 1000 गोल्ड की नेटवर्थ लीड यहाँ पे टीम लिक्विड के खेमे में। बट धीरे धीरे जब लेवल्स बढ़ते गए, जब यहाँ पे उनके कोर्स फार्म करते गए, तब देखना पड़ेगा लिक्विड को कहीं ना कहीं ये गेम को थोड़ा सा मिड या फिर मिड टू लेट मिड गेम तक ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि एंड गेम में अगर एम्बर को उनके आइटम्स मिल जाते हैं, एनपी भी अगर फुली स्टैक हो जाते हैं, तो हमेशा एक पोटेंशियल रहता है। स्पिलिट पुश, कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट ये देखिए हस्कर क्या ही करें,
यहाँ पे इतना ज़्यादा डैमेज पड़ जा रहा है, इतने लो एचपी पे हमेशा रह रहे हैं। अटैक स्पीड तो जाहिर सी बात है मिलता ज़रूर है, बट चलिए एक राहत की सांस ओजी को मिलती हुई टस्क के किल के स्वरूप। और यहाँ पे देखिए बीजीएम आए ज़रूर हैं यहाँ पे जी, थोड़ी सी हलचल पैदा करने, थोड़ा सा हरासमेंट एंड दैट्स इट। एनालिस्ट ने भी ये चीज़ डिस्कस करी थी जॉनी कि यहाँ पे एम्बर के लिए अगर ये ब्रूडलिंग्स जाते हैं इंस्टेंट, मतलब एक स्लाइड ऑफ फिस्ट मारेंगे और सब खत्म। ये काफी ज्यादा इंटेंस हो जाएगा, बट टाइनी को एक बार फिर से धर दबोचा गया और इस वक्त एक नहीं 4 लोग इनकी पिटाई करने आ चुके हैं। पीट के वापस भेजा बेस में और अब अगले 15 सेकंड बाद टाइनी हमें वापस अपनी लेन में नजर आएंगे। क्या कहना चाहते हैं क्रैट, ये आपकी फेवरेट टीम, हमारे प्यारे मित्र दर्शन की भी फेवरेट टीम। I'll never say that कि ये लाइनअप मेरा फेवरेट है। I think I appreciate OG का OG लाइनअप। हाँ, I appreciate few players in this lineup, especially Amar. Okay, I like BZM, but after watching incredible gameplay of Yuragi, I just want that post. Thank you services वाला। But I think ये एक सही वक्त आ चुका है कि हमारे जो प्यारे मित्र हैं मिस्टर दर्शन, उनको वीडियो कॉल करा जाए। नहीं, I think it's not the perfect time. नहीं, we have been given a responsibility. ब्रॉडकास्ट पे हम कॉल नहीं कर रहे। आपकी जो डिमांडें हैं बढ़ते जा रही है, जैसे शादी होती है ना, फूफा आते हैं जो बोलते हैं पकोड़े कच्चे, वैसे आपकी हालत हो गई है, आप डिमांड ही मारते रहते हो। बट यहाँ पे देखो हमारा एफ ने यहाँ पर ब्लड सीकर को पिक ऑफ कर लिया है। ऑल द लिक्विड के पास अभी एडवांटेज है, बट मीशा को यहाँ पर रंगे हाथ पकड़ लिया है, बट वो आइस शार्ड्स के अंदर बचते हुए तो भगाएंगे। बट मिकी उनको चेस कर रहे हैं, बट पीछे से युरागी आए और अब वो यहाँ पर उनको मार के रहेंगे। 2K की नेटवर्क 6-2। एक रिमाइंडर दे दूं मैं अपनी ऑडियंस को और सारे दर्शकों को और इवन ओजी को, अगर सेव हमारी स्ट्रीम देख रहे हैं उनको हिंदी समझ में आती है, कि अगर ये गेम वो हारते हैं देन उनका TI 2022 से सफर खत्म हो जाए। मतलब कोई वाइल्ड कार्ड नहीं, कोई चाचे मामे के रिश्ते नहीं। क्या और ये देखिए बीजीएम जो सेब के ग्रैंडसन अपने आप को कहलाते हैं, अब इनके भी थोड़े से हालात टाइट चल रहे हैं। 6-2 का स्कोर लाइन, 2000 की गोल्ड नेटवर्क लीड और यहाँ पे चारों तरफ मंजे पड़े थे। बट चलिए राहत की सांस टीम ओजी को, वो सपोर्ट पिक्स मिल चुके हैं, थोड़े से उनके कोर को हल्का फुल्का फार्म मिला है। एनपी भी आ रहे हैं यहाँ पे। युरागी को समझ में आ गया कि लेन में बैठ के कुछ नहीं हो रहा था, अब चलिए रोटेट करते हैं, थोड़े बहुत गैंग्स करते हैं और यहाँ पे फाइट्स निकालने का प्रयास करते हैं। बट यहाँ पे जैसे क्रैट ने बोला था, मैं भी पूरा सहमत हूँ, क्योंकि टाइगा के एवलेंच और स्टन्स तो चाहिए ही चाहिए हर एक फाइट में। अगर वो हो जाता है फॉलोअप के नाम पे, अगर हमको एनपी भी वहाँ पे नज़र आते हैं, फिर मॉर्टिमस केस, तो कॉम्बिनेशन तो बन सकता है। बट ये जो टस्कर खेल रहे हैं यहाँ पे बॉक्सी, ये इट्स बिकमिंग सो डिफिकल्ट टू डील अगेंस्ट हिम, राइट? क्योंकि आप देखिए कितना अच्छा मैप कंट्रोल ले रखा है। आई मीन टियर 1 एक के बाद एक सारे उड़ाते जा रहे हैं और यहाँ पे आगे खेलने की जो संभावनाएं हैं ओजी के, वो काफ़ी कम हो चुके हैं। दे विल हैव टू सर्च फॉर अ स्मोक गैंग, दे विल हैव टू गेट फ्यू मोर पिक ऑफ्स, स्पेशली कोर्स के। अगर यहाँ पे जो उनके हाईएस्ट फार्मर्स हैं, यहाँ पे मीके या फिर यहाँ पे उनके ऑफलेनर जाई को पकड़ सकते हैं किसी हाल में, तो थोड़ा बहुत फायदा आप बोल सकते हो ओजी को हो सकता है। फिक्सेस कोई फायदा नहीं होगा, ये गेम ज़्यादा देर नहीं चलने वाली। अभी देखिए तीनों के तीनों कैरीज जो है टीम लिक्विड के, हमें टॉप वर्थ की लिस्ट में टॉप 3 में नज़र आते हैं। पिछली बार ये देखा था, इससे पिछले वाले मैच में जब PSG.LGD ने अपने डिसाइडर पे काफ़ी अच्छी तरह इनफैक्ट पिटाई करी थी बीस्ट कोस्ट की, तो आई थिंक कुछ सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे रहने वाली। लशरैक है, ब्रूड मदर है, बट वो ब्लड सीकर तबाही मचाएगा काफ़ी ज़्यादा। ही इज़ अ मैन ऑन अ मिशन, ही इज़ जॉन विक। जी हाँ, बहुत ज़्यादा। और देखिए फिर से टाइगा के ऊपर इनिशिएशन, और इस बार तो एक छोटे से क्रीप को टॉस करके भेजा था जाई के तरफ, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बॉक्सी का एक बहुत ही बेहतरीन टस गेम चल रहा है, क्योंकि वो पहले से ही कोशिश कर रहे हैं कि ये टाइनी को ना कभी बड़ा होने ना दें। क्रैट, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्या आपने कभी ख्वाब नहीं देखा कि आपको टीआई खेल?
या फिर आप CS:GO मेजर्स के ख्वाब देखते थे? The maximum MMR I have touched in Dota is 3960. I was 2 games behind to be 4K. That time it was Badman patch and मैं इतना कभी अच्छा था नहीं Dota में. 4K is very mediocre. जो अब 3K वो पहले 4K होता था. उस टाइम पे इतना लोग खेलते भी नहीं थे और मेरे दोस्त लोग बहुत अच्छे थे उस टाइम पे. बट जब उनको देखता था they were 7K. You know, उस लेवल तक पहुंचने के लिए मैंने कभी क्या नहीं. बट हाँ मुझे काउंटर स्ट्राइक का बड़ा मन था मेरा मेजर खेलने का. मेजर तो नहीं बट इंडिया में एक अच्छे लेवल पे खेलने का. जब बट ये अभी के लिए ओके उन्होंने यहाँ पर क्या करेंगे कर दिया. बट इट्स आई थिंक इट्स टू लेट बिकॉज 4 रेडिएंट प्लेयर है उसके बीच में हंसकर कितना भी बफ हो बचने का सीन ही नहीं. बिकॉज यहाँ पर रिचुअल भी पड़ गया था उसके बाद रप्चर पड़ा हुआ था लाइक नो सीन. बट ये देखिए ना ये हुई ना गलती. बटुम्बा मैन अपनी हदें भूल गए थे और उनको उन हदों को ही याद दिलाने के लिए आए और इंसेनिया पे हुई है बमबारी. हवाई हमले हुए हैं. अरे, और ये सीरिंग चेंज के अंदर उनका टीपी क्या कैंसिल और टस को भी मार गिराया और इसी के साथ ओजी का हल्ला बोल. दिस वाज एन ओजी प्ले. ये था ओजी का प्ले. और देखो इनको दर्द होने लग गया है फिक्सेस को. इनके तो दर्द होना चाहिए. मुझे क्यों दर्द होगा, मेरी टीम तो वैसे ही बाहर हो चुकी है. अब मैं हो गया हूँ टीम टुंड्रा के सपोर्टर. टीम टुंड्रा फॉर द विन. और वो मैचअप भी एक ऐतिहासिक वाला होने वाला है. टीम सीक्रेट वर्सेस टीम टुंड्रा. जो भी जीतेगा जाएगा ग्रैंड फाइनल्स की तरफ और वो टॉप 2 पोजीशन अपने पॉकेट में सिक्योर कर लेगा. आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे? टीम टुंड्रा. नहीं हाँ इजी कर रहे थे. हाँ अरे वो तो चल बसे है. अरे बट अभी ओजी भी चल बसने वाली है तो हमारी ओजी को सिर्फ पास ही किया भाई. ठीक है चलिए अब देखिए अच्छी बात है ये कि यहाँ पे लेशरैक को बचा दिया गया है. मीके को किसी हाल में. बॉक्सी ने बेहतरीन प्ले रीइनिशिएशन हुआ है. यहाँ पे माटुम्बा मैन आ चुके हैं और देखते ही देखते स्नैप फायर को सूली पे चढ़ा दिया है. टाइगर पीछे ऑन द रिट्रीट और इसी के साथ 1 for 2 ट्रेड हो चुका है. अब देखना ये रहेगा कि ओजी तो चलिए पॉजिटिव ट्रेड्स निकाल रही है और जो कोर्स इनको चाहिए थे कुछ किल्स मिल रहे हैं फाइनली. यहाँ पे एम्बर देखिए अच्छा खासा गेम जा रहा है और BGM अगर ऐसे खेलते गए तो आई थिंक एक पॉइंट आएगा जब उनकी छक चलेगी और बातें बहुत करेगी. जो नाम आपने लिया ना BGM वो बंदा है जो मतलब कहर बरसा रहा है इस गेम के अंदर. एवरी सिंगल फाइट इज इन्वॉल्व्ड इन, दे आर विनिंग, दे आर गेटिंग अ पॉजिटिव ट्रेड. 1 से 2 पिक्स निकाल रहे हैं एंड वी हैव अ स्पेशल गेस्ट इन टाउन. वन ऑफ द बेस्ट Dota 2 players in India at one time. Mr. Arrow has just stepped into the studio. काफी पैसे दिए थे इन्होंने. उनसे पूछते हैं Mr. Arrow आप हमें इशारों में बता दीजिए because I know आपको अगर हम हेडफोन पहनने बोलेंगे तो आप हमारी पिटाई करेंगे. Who do you think is going to win, OG या TL? इस समय फिलहाल के लिए he is analyzing. ये हमारी तरफ बात नहीं करते, देख के बोलते हैं. I think he will root for the aggressive 5 क्योंकि एग्रेसिव 5 मिस्टर एरो की टीम थी और उन्होंने बहुत. और देखिए जॉर्डन देख रहे डियोर. ओह माय गॉड दिवाली आई है गाइस. दिवाली आई है. सारा कैश भाई गुप्ता के पास. 8-10 लाख तो ऐसे. Let's not get distracted. We asked him a question, guys. अरे बट सुनिए तो जॉनी उसके बीचों बीच BGM को उड़ा दिया है. यहाँ पे जो बात कर रहे थे कि टॉप नेटवर्क पे चल रहे हैं तो ये हवाबाजी निकाल दी सारी. ये बात तो ओजी को समझनी चाहिए ना. एक प्लेयर मार रहा बचाओ उसे. फॉर प्रोटेक्ट वन. अब अपने कंफर्ट पिक्स पे जब खेल रहे हैं जो आगे अपने NP पे हैं. अब हंसकर ये जो पिछले गेम में सेंटर वॉर रनर का जो अर्ली इम्पैक्ट था अमार का, इस गेम में हंसकर का कुछ खास तौर पे करते हुए देखा नहीं हमने. अब देखिए किस तरीके से बेचारे यहाँ पे पकड़े गए हैं हमारे प्यारे टाइगा और उनको भी मौत के घाट भेज दिया जा चुका है. अब 11-9 की स्कोर लाइन टीम लिक्विड के पास. वो 2000 की नेटवर्थ लीड रोशान भी गवा चुके हैं. तो ओजी का इस टूर्नामेंट पे रहना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और ओजी और टीम लिक्विड के सर्वाइबिलिटी के बीच में खड़े हैं तो सिर्फ एक ही प्लेयर, दैट इज़ गोइंग टू बी युरागी. अगर NP के साथ कुछ जादू दिखा दे, अगर इतिहास के पन्नों में झांक के देखे तो ऐसे कुछ NP प्लेयर्स थे जिन्होंने काफ़ी गेम बदला था, जो प्रेशर लेन्स पे बना के रख सकते हो और काउंटर प्रेशर. एक एग्जांपल दे दो और वो एग्जांपल मत देना जो सबको पता है. एक और एग्जांपल दे दो उसको छोड़ के. एडमिरल बुलडॉग. हाँ आई न्यू इट. आई जस्ट न्यू इट. आप लिटरली 8-9 साल पुरानी बात करो और कोई नेचर प्रॉफिट नहीं पता आपको.
देखिए अरे एग्जांपल सामने है मिस्टर एरो। मिस्टर एरो हर आपने जगह है, उनके आप तो हर एनपी देखे जगह हैं। देखिए मेरे को पता है इसका जवाब, बट मिस्टर एरो आपसे फिर भी दरख्वास्त है, जॉइन अस ऑन द पैनल। हमने एक काउच आपके लिए पूरा रखा है। पूरा काउच आपके लिए है। जॉनी अपना हेडफोन भी थमा देंगे। अरे हमारे पास हैं और चालू कर देंगे। और 5 हेडफोन्स हैं हम और ले आएंगे और पूरी यहाँ पे महफिल बैठेगी। लगे हुए। अरे और 10 लगा देंगे, कोई दिक्कत वहाँ नहीं। पे बटन दबाने ऑन हो जाएंगे बस। अरे हम दबा देंगे। अरे भाई कर लो क्या बहस। अभी आधे को मिड पे एक अच्छी खासी महफिल जमा रखी है यहाँ अरे पर। वो हो चुकी ये है फाइट। ये पिछले मैं फाइट का आपको ये तो टेस्ट ले रहा था। ये तो वही चीज हो गई जैसे हम स्लार्क भूल गए थे क्रैक। उस दिन भाई देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारे देखो नॉडविन प्रेमिसेस के अंदर द uttermost, the pro, the supreme Dota player is only one, the number one, the oldest, the OG भूटानी। मिस्टर भूटानी। भूटानी के ऊपर कोई नहीं। और यहाँ पे ओ फिर से पकड़े जा चुके हमार DF। और what DF? Fixes I want to ask you, हमार द F में F का क्या पूरा मतलब है? फादर। हमार द फादर। जी हाँ। तो आपका कुछ बातचीत है क्या? Cause you daddy father. Yes. आपका मतलब फिक्सेस में F भी फादर है? नहीं, वो तो हमारे परम पूज्य FY के नाम पे है। बट FY कौन सा हीरो सबसे अच्छा खेलते थे? अरे ES भी बढ़िया थे, रूबिक भी बढ़िया थे। अरे भाई रटा हुआ है पढ़ के मुझको। हाँ होमवर्क करके आए हैं। चलिए आज दिवाली का माहौल है, दिवाली ईव, और जितने भी सिंगापुर से लोग हमें देख रहे हैं। Everyone just to clarify, भांग नहीं पिया हमने। देखिए दिवाली पे भांग नहीं पीते जॉनी। ये क्या गुड़गांव का ट्रेडिशन है क्या? जैसी मुंह से आवाजें निकल रही है ना फिक्सेस इस टाइम पे, कोई भी सोचेगा ये कुछ करके बैठे, बट नहीं, एवरीवन इज लाइक कंप्लीटली इन देयर सेंसेस। हम बस रेड बुल शक कर रहे हैं। आपने है क्या प्यार पीने की बात कर रहा था, फिक्सेस करने की नहीं। अरे मोहब्बत भी तो एक नशा है जॉनी, बट फिलहाल इनको हटाओ यार, कोई इनका माइक बंद करो। फिलहाल के लिए देखिए फाइट हो चुका है और युरागी यहाँ पे फिसल चुके हैं, उनके साथ जा चुके हैं मीशा। 3 प्लेयर्स OG के खत्म और अब बचा है कुछ भी नहीं। अगेन मिस्टर एरो टीएल ले आओ जी। टीएल विल विन इट। ऑलराइट, वर्डिक्ट आ चुकी है मिस्टर एरो की, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। 12 मिनट मतलब 30 मिनट का हिसाब लेके चल रहे हैं। हाँ। बहुत ही बेकार मजेदार बात है। नहीं मजेदार बात है, मैं भी यही चीज बोलने वाला था गेम के स्टार्टिंग में कि 30 मिनट में ये गेम टीएल खत्म करेगी। देखिए मुझे भी ऑलरेडी मेरे महारथी लोगों ने बोल दिया था कि ये 2-0 होने वाला है। और so Krat, it's you against everyone else. हाँ आप मतलब वो वही हो। Even I want Team Liquid to win because I always support। अरे देखिए हमारे के हालात क्या हो रखे हैं, बेचारे उनको समझ नहीं आया क्या हुआ उनके साथ। कल मैथ्यू ऐसा खेल रहे थे ना? मैथ्यू अरे वो तो वो एक अलग ब्रह्मांड में थे कल। He Amar is ending world hunger right now. हाँ और मतलब ये जो हस्कर हैं बेचारे, इनको जल्दी से जल्दी रामबाण चलाना है। दिवाली तो चलिए, दशहरा ख़त्म हो चुका है, बट आई थिंक इनकी पार्टी अभी भी चल रही है। बट फिलहाल के लिए लिक्विड चारों तरफ फैली हुई मंजे हुए। अब हम उस फेज़ में जा रहे हैं जहाँ पे OG को अगर कोई बचा सकता है, कुछ बचा सकता है, वो होंगे बेहतरीन गैंग्स। ये टाइगर कहाँ आ गए हैं, मेले में अकेले बिछड़े हुए। अरे मीशा की बारी। हर मैप के हर जगह पे टीम लिक्विड के प्लेयर्स OG के प्लेयर्स को पकड़ के मार रहे हैं, और इतनी बुरी तरह मार रहे हैं कि कोई जवाब ही नहीं होता। वो एक जगह पे खड़े मर जाते हैं। अरे बेचारे सेंट्री तो ले लो, थोड़ी तो जंगल कंट्रोल तो रख लो। दे हैव नो विजन, दे हैव नो मैप कंट्रोल, नो मैप प्रेशर। प्लेयर्स के पास फार्म अच्छी नहीं है, आइटम्स नहीं है। टीम लिक्विड टियर 3 पुश कर रही है, बिल्कुल मिड लेन खाली करते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुझे तो लगता है भाई भुट्टो को ले लेना चाहिए अभी, मतलब युरागी की जगह। अच्छा किसको? भाई भूटानी को। मुझे लगता है इंटरनेशनल जा रहे हैं, फिर तो वो दिल्ली के कैफे से बाहर नहीं जा रहे। ऐसे ही सांड चाहिए OG को। And it's pretty easy to get him. You just need to give him proteins. Promise him infinite supply of proteins. प्रोटीन and पाउडर gym. खिला दीजिए। अच्छा जिम। अरे OG के पास वो है, अरे इतना बड़ा गेमिंग हाउस बना रखा है। होटल ने अपने लिए एक मैंशन बना रखा है, और वो बस पर्सनल घर है। अरे ये नोटेल का है वो। हाँ नोटेल का, सॉरी। अरे बट जब भाई भुट्टू का जलवा ही कुछ अलग है, बेच देंगे। अभी नहीं हो पाएगा, अब तो टीएल
टॉप लेन भी खाली कर दिया, वो बॉट लेन जाके बॉट लेन को खाली करेंगे मेरे ख्याल से। अरे बेचारे इनको पेड़ों के बीच यहाँ पे लपेट के डैमेज तो दे रहे हैं बट कोई फर्क नहीं पड़ता। पल्स नोवा का इस्तेमाल, स्प्लिटर आता है, टाइगा वापस कर, बीके भी लगा के देखिए प्लेयर जहाँ पे भाग रहे हैं, फाइट लेने के कोई अवस्था में नहीं। और अब देखिए युरागी का भी अंत यहीं पे हो जाएगा और इसी को आगे बढ़ा के जल्द से जल्द जीजी कर देना चाहिए जॉनी, मुझे लग रहा है। क्यों यहाँ पर कोड्स मर रहे हैं और एक तरफ सपोर्ट मर रहे हैं, तो जो ये ट्रेड हो रहे हैं ना ये कुछ खास पसंद से नहीं आ रहे। एंड व्हाट आई कैन फील कि भाई व्हाट आई कैन सी एंड से कि भाई अब ना कोड्स में बहुत फ़र्क आ चुका है। आई सॉ बीजीएम अटैकिंग ब्रूड को लिटरली फ़र्क नहीं पड़ रहा जी। अब ये चीज़ अमार के पास आइटम देखो, 250 रुपये का विंडेज, 500 गोल्ड का एक ब्रेसर है और 500 का एक नाइकी का जूता। अगर आप ये फार्म लेकर उम्मीद कर रहे हो कि आप 22-23 मिनट के सामने ब्लड सीख कर इनको फेस करोगे, देन आई थिंक यू आर इन योर एलिस वंडरलैंड। और मैं भी युरागी ने टिक किया है बीजीएम को, मतलब यहाँ पर ये ना ओजी के एटीट्यूड में है, मतलब उस रैबिट होल के अंदर जा चुके हैं जिसका एस्केप राउट नहीं है। वी नीड टू कॉल देम। लगाइए फोन, आज तो फोन करवा दीजिए, ऐसे मतलब हाथ भी हमारे काफी लंबे हैं। किसको? Such a great name is getting flawed. अरे बट ये भी तो देखिए, ये एक तरह से 2019 का बदला है। अरे 2019 की वो जो महफिल थी वो अलग थी, वो प्लेयर जो थे वो अलग थे। तो दोनों साइड से अलग थे ना, अभी भी तो दोनों साइड से। अरे बट फिर भी बात तो सही है, जॉनी इज राइट। जॉनी इज राइट। प्लीज आप नीचे चले जाओ। मैं कहाँ जाऊँ क्रैड, आपको उधर जाके दूर जाके बैठो। हाँ अब नीचे जाके हो गया। हम सब आए थे ओजी को सपोर्ट करने, जॉनी नहीं अब हम कुर्सी छोड़ा था। अब हम टीम लिक्विड सपोर्ट कर रहे हैं। 2019 का बदला चाहिए। अरे बदला ले लिया है इन्होंने। साडा हक अरे ये लिक्विड बोल दिया। किधर जा रहे हो आप? रप्चर लग गया, हालत टाइट, पतलून गीली तो और इसी के साथ देखिए ऑलरेडी। सो द प्लान इज, अभी प्लान मैं बताता हूँ गेम प्लान क्या है। ओजी जीतेगी जब 30 मिनट हो जाएंगे, तो जैसा हमारे एरो भाई ने बोला कि अगर 30 मिनट में गेम खत्म नहीं करी ओजी कमबैक कर सकती है, तो 30 मिनट होने के बाद हम अपना बफ वाला सॉन्ग गाएंगे। ओके और फिर ओजी का कमबैक हो जाएगा। जी हाँ, और लेट्स गो। बैटल फ्यूरी भी फार्म होने वाला है ना उसका एम्बर का। ये देखिए दूसरा यहाँ पे एजिस लग गया है। अब भाई एरो की बात हमारे दर्शकों को कोई पहुंचा है? जो चीज बोला था ये हमने स्टार्टिंग में भी पुष्टि करी थी कि एम्बर इज देयर ऑलवेज, अपने स्लाइट ऑफ फिस्ट के साथ डैमेज तो रहेगा। और वही बात आती है, मतलब ओजी की कंटिजेंसी पॉलिसी यही रहेगी कि थोड़ा सा स्प्लिट पुश बरकरार रखें उधर, वहाँ पे वो एक लेन संभाल के रखें, लेन्स पुश ना होने दें, सुबह अभी होने ना दें, क्योंकि 90 से 10% का भी विन रेट चांसेस है लिक्विड के। और सुबह होने ना दे ऐसा अभी ये गाना तो एप्ट नहीं है यहाँ पे ओजी के लिए। सुबह नहीं होने दे रहे ना लिक्विड। ओजी तो डेफिनेटली चाहेगी सुबह हो जाए, सो दैट दे वेक फ्रॉम दिस नाइटमेयर। अरे लोग सब सुबह पे भी दिन में भी सपने देखते हैं। आपने अभी इतना अच्छा दिन पे सपना सोना बंद कीजिए। नहीं आपने दिन में जो सपने अभी देखे हैं थोड़ा हमें हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। नहीं मेरे सपने मेरे प्राइवेट, आपने हमें तो बताया था बट दे आर माइन एंड माय थेरेपिस्ट। चलिए अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे फाइट की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। टाइगा ब्रदर ना अपने आप को समझते हैं। टाइगा को लगता है कि ये कुछ बहुत बड़े प्लेयर हैं, हाँ ठीक है, बट ये हमेशा अपनी टीम से इतना लग क्यों चलते हैं ना? ब्लिंक है, पेल आउट स्क्वाड वाला तो ये टाइनी खेले, स्टंट टॉस कॉम्बो वाला, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा। एनजीओ चल रही है, एनजीओ चल लिटरली ब्लड सीकर के आधे आइटम की गारंटी बंदे ने अकेले खुद ले रखी है यार। चलिए मतलब बोल रहे हैं कि आप अगर जीत रहे हो अच्छे से जीतिए। यहाँ पे डायरेक्ट जा रहे हैं अभी उनके बॉटम टियर 3 के तरफ और आखिरी डिफेंस इन्होंने यूज कर दिया है और इंतजार कर रहे हैं टाइनी का, जो कि गेम का वन ऑफ द डिसाइडिंग फाइट्स हो सकता है। अगर ये फाइट हार जाते हैं तो लगभग जीजी कॉल आउट कर देना अभी चाहिए। तक फिक्सेस कोई फाइट नहीं जीते, अभी कैसे जीतेंगे? अरे नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ जीत जाते हैं लिक्विड तो। अच्छा हाँ। भावनाओं को समझिए। देखिए यहाँ पे मॉर्टिमर का चुम्मा, यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश, फ्रीजिंग फील्ड डाल दिया गया है और आंख पलक झपकते ही यहाँ पे टाइगा भी फिनिश और उसी के साथ यहाँ पे चलिए बॉक्सी को फर्क नहीं पड़ता। क्यों गए थे? अरे मन क्या उनका, हेलो बोलने गए थे। हाँ हेलो बोलने गए थे
और यहाँ पे टीम लिक्विड ना थोड़ा ओवर एक्सटेंड नहीं करना चाह रही, वो थ्रो नहीं करना चाह रही इतनी अच्छी लीड के बाद। और ये कहाँ आ चुके हैं जी, ये गलत रास्ते चल गए थे BGM, और यहाँ पे वापसी का कोई संभावना अभी नहीं था। देखिए अभी सिचुएशन क्या है, ओजी के बेस को छोड़ के एवरी अदर पार्ट ऑफ द मैप, लिटरली बेस के जो नीचे सीढ़ी आती है वो सीढ़ियों के बाहर ही बिहाइंड एनिमी लाइंस हो जाता है उनके लिए। वो सारी पूरा का पूरा मैप जो है अब TL का है, और उनसे वो जगह कोई नहीं छीन सकता। नो वन इज गोना टेक दैट कंट्रोल अवे। धीरे धीरे मिड की भी वेव देखिए आगे बढ़ रही है, टॉप की भी वेव आगे बढ़ रही है। जब तीनों वेव्स क्रैश होंगी, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर देम टू क्लोज दिस गेम आउट। टॉप बॉट बैरक्स अभी डिस्ट्रॉय करेंगे, अगला टारगेट जो होगा वो होगा मिड टर्रेट, और उसके बाद जाएंगे टॉप। सीक्वेंस में ये लेन्स खाली होंगी। आप देखिए ना, मतलब अब जो हालत हो रखी है यहाँ पे टीम ओजी की, उनके पास कोई मैप का विजन है ही नहीं, समझ रहे हैं? मतलब पूरे चारों तरफ कुछ सारे जितने वार्ड्स दिख रहे हैं, मुझे सिर्फ रेडिएंट वार्ड्स दिख रहे हैं। फिक्स टू बेस से बाहर नहीं जा सकते तो विजन कैसे मिलेगा? और यहाँ पे मतलब कुछ भी है नहीं। जब वक्त था वहाँ पे विजन बचाने का, तब उनके सारे कोर्स को जंगल में घूम घूम के दर दबोचा था जी। अब बॉटम तो उड़ा दिया है, अब जा रहे हैं मिड के तरफ। मिड पे भी कोई मतलब खास तौर पर परेशानी नहीं होगी। चलिए इनिशिएशन किया है, नो पेड़ चारों तरफ यहाँ पे अगला टॉप जाएगा मीके के, बट उनको क्या फर्क पड़ता है इस समय। नो लेशरैक भी अभी देखिए किसी को मान नहीं रहे, बट यहाँ पे डैमेज तो हुआ था। जी हाँ अभी मतलब कोई हार्ड कमिटमेंट नहीं है। चलो वापस से रिट्रीट। तो टीम लिक्विड जहाँ पे लगता है कि शायद एक पॉइंट पे आके गलतियाँ करेगी, कोई गलती नहीं कर रही है, ऑब्जेक्टिव सिक्योर कर रही है, आगे बढ़ रही है गेम जी। एंड आई थिंक अगेन युरागी किसी तरह अपने आप को छुपाते हुए बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये देखिए लेशरैक ने टीपी किया था बिकॉज ही वाज एक्सट्रीमली लो, और थोड़ा सा रिकवर करते करते वो वापस आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। थोड़ी देर में ओजी हमको फिर से नज़र आएगी, डिपेंडिंग ऑन कौन सी लेन पे उनकी वेव आगे जा चुकी है। उस लेन के टियर 3 टावर और बैरक्स को हमला बोला जाएगा। आई थिंक मिड पे ही इनका अगला फोकस है, तो वही वो सीक्वेंस जो है उसको ब्रेक नहीं करना है। लेकिन एक ऑलराइट 2v2 फाइट थी बेसिकली, बट इसमें भी मटुम्बा मैन कितने हो गए, कितने किल्स हैं? 9, 2, 8 असिस्ट है, ढेर सारे किल्स हो गए उनके। बट यहाँ पे बातचीत यही है कि यहाँ पे जिस जगह पे लाके खड़ा कर दिया, ये तो जीजी's कॉल दे देना चाहिए अभी। हाँ, कि ना कोई आइटम बन पाया यहाँ पे। अमार मैसिवली फेल कर गए, यहाँ पे उनको पूरा शटडाउन कर दिया था। लिक्विड एक रणनीति के साथ आई थी, और कहीं ना कहीं ये हस्कर का जो इतनी अर्ली रेवोल्यूशन sort of became the Achilles heels for Team OG, and they were so well prepared, countered him, and अब इनको फर्क नहीं पड़ता। अब जीजी कॉल आउट तो दे ही दीजिए, क्योंकि हमार भी डाउन हो चुके 50 सेकंड के लिए। ये युरागी बीकेबी के सहारे कितने देर जीवित रहेंगे? अब जो पूरी दूसरी जो निगाहें रहेंगी यहाँ पे टीम लिक्विड की, जो कि ऑलरेडी ब्रूड मदर कर रहे हैं अपने ब्रूड लिंक्स के सहारे। टॉप टियर 3 यहाँ पे वो भी समाप्त कर देंगे। बेचारे प्यारे मिशा यहाँ पे इकलौते मंडराते हुए। टाइगा भी आ गए अपना किल सौंपने। टॉप बैरक्स कुछ खास सा नहीं बचा इस गेम में, बिकॉज BGM और जब मिशा एक साथ पिक हुए थे उसकी वजह से दे लॉस्ट द मिड बैरक्स। अब टॉप का भी कुछ खास है नहीं, और नेटवर्क की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 23,000 गोल्ड की एडवांटेज। रॉश से थोड़ा सा गेम थोड़ा सेफ हो जाएगा, बिकॉज यू कैन नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ नेचर प्रॉफिट। नेचर प्रॉफिट कोई सी भी गेम को उठा के लाकर जिता सकता है। और अगर आप नोटिस करो गाइस, इतनी बुरी गेम में भी टावर्स नहीं है उनके पास भी। टियर 3 बचे हैं उनके पास, मिड की लेन बची है, बट टॉप और बॉटम दोनों युरागी खा चुके हैं। तो अगर एक आधा गैंग उल्टा नीचे हुआ देन फर्क पड़ सकता है। बट बात वही आती है, पूरा जो गेम था लेट गेम के तरफ अगर ट्रांजिशन करता है, देन वी कैन से कि हाँ ओजी के पास चांसेस है, बट ये वहां तक जा ही नहीं रहा है जॉनी। 31 मिनट हो चुके हैं गाइस, वी नो व्हाट वी हैव टू डू। ऑलराइट मिस्टर स्क्वाड्रन, वी वुड लाइक यू टू जॉइन अस इन आवर एंथम एज वेल। चलिए इस बार विशाल को भी ले आते हैं, और फाइट और फाइट शुरू होने से पहले ही टाइगा यहाँ पे बेस की तरफ वापस जाएंगे। यहाँ पे किसी तरीके से उनके स्नैपर निशा यहाँ पे बाय बैक करके आए जरूर थे, बट यहाँ पे ऑलरेडी डेथ हो चुका है उनके प्यारे अमार डीएफ का। अमार डीएफ का स्टैट्स में ज़रूर देखना चाहता हूँ इस गेम के अंदर किस प्रकार रहे हैं। और देखिए यहाँ पे लिक्विड को आगाज़ हो चुकी है कि ये उनके आखिरी सेट ऑफ रैक्स होंगे, और इसी के साथ उनकी जो विजय
तय। I mean यहाँ पे I don't see a world where Liquid lose this। और ये एम्बर के किल के साथ अब तो लिख दो GG। I think it's over. Even they know This it's is over. harsh, man. Because Liquid literally dominated them throughout the game. ये बीट डाउन था, ये गेम नहीं था, ये बीट डाउन था। आप लोगों ने वो मीम देखा है जिसमें सिम्पसन्स का एक स्टिल होता है जहाँ पे क्रस्टी द क्लाउन जो होता है वो किसी की पिटाई कर रहे होता है और क्राउड में एक बंदा चिल्लाता है स्टॉप ही इज डेड। आप दिल्ली वालों के बीच में हो, आप सिम्पसन्स के मीम्स नहीं डाल सकते। क्रैट देखते हैं सिम्पसन्स? कहाँ देखते हैं? सिम्पसन्स के 4 कैरेक्टर के नाम बताइए क्रैट। मैं यहाँ पे सिम्पसन्स काम बोल कर दो, रहा पूरा हूँ, परिवार है, please disturb 5 हो मत करो जाएंगे। fixes आप। देखिए for God's sake, आपने न्यूसेंस फैला दी है पूरी। इनको तारक मेहता पूछिए, सब पता होगा। न्यूसेंस तो क्रैट आपने फैलाई थी, दैट वाज योर टीम। फैलाई नहीं थी हमने, मचाई थी। आओ बट ये देखिए बचाएंगे। जाई के ऊपर चलिए फाइनली अमार दिया है गुस्से में आते हुए। जाई को मारने के लिए ना 1.5 घंटा लगा है और ऊपर से मर गए। जाई मरे नहीं है। चलिए फाइनली डाल दिया है। What a game by Team Liquid. Amazing win, दो शून्य की स्कोर लाइन से मात देते हुए OG को। Yes. Aster and PSG, two Chinese titans. तो आलू पूड़ी सब लेकर बैठना। मेरी आलू पूड़ी तो आई नहीं है अभी तक। Taiga, Misha, everyone, hard luck अरे guys. फिर भी हंस रहे हैं। Thank you so much for the services. देखिए they had fun. They had fun. खासतौर से BGM का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो अच्छा था। So he does not care. देखिए Let's go Liquid। ये मेरा फेवरेट है। Let's go Liquid. Turn. Let's go Liquid. देखो like they're like that's the mild celebration. But I think they have a good future ahead. Definitely. I mean टीम लिक्विड के साथ है और अगर इस तरह से खेलते रहे काफी आगे जाएंगे। ये देखिए हमारे भाई साहब। कौन है? जेरैक्स जी। ये जेरैक्स है? अरे माता रानी ये ऊपर वाले ये ऐसे दिखते थे कुछ। विशाल wants to kill you right now, you know? मतलब अगर ऊपर ढेर है अंधेर नहीं बट उठा ले। जेरैक्स बोल रहे हैं। बॉक्सी को जेरैक्स बोल दिया। सॉरी अरे उनके भाई यार जैसे भाई आपकी नजर में आरटीजी ने 2015 का इंटरनेशनल जीता है, ठीक है? और क्या स्टेटमेंट दी थी इन्होंने कल परसों? ये जेरैक्स है? ये जेरैक्स है। 2 हो गए, तीसरी क्या है इनकी स्टेटमेंट? और भी कुछ बोला था इन्होंने। देखिए क्रैट चीजें तो हम बहुत चीज बोलते हैं बट आप अगर हर चीज दिल पे लेके बैठोगे। दिल पे नहीं ले रहे हम, आप स्ट्रीम पे ले रहे हो। अरे चलेगा। कैसे चलेगा? Fixes, this is not done. Be a little professional, man. आप कह रहे ये क्या बात कर रहे हो भाई? ये खराटे जा रहे हो हमारे जेरैक्स। So it was your job to look after. मैं तो आपके पीछे था। मैं यहाँ था ही नहीं। ये सोफा क्यों रखा हमने? ये सोफा हमने ये बेसिकली कैसे ओजी वाले आने वाले। हाँ, हमारे पास जब बड़े गेस्ट आएंगे, जैसे एरो आएंगे, एरो भाई साहब आएंगे, नासिर भाई साहब आएंगे। हाँ, जब मतलब बड़े लोग आएंगे, मतलब नासिर जब आएंगे तो he's getting like very jacked these days. जिम जा रहे हो आजकल तो वो मतलब you know अब उनका राज सिंहासन है। ओह फिर तो हम गैंग बना सकते हैं। नासिर एंड क्रैट देयर, the two Dota pros, और आप और मैं यहाँ पे बैठेंगे, the noobs। मैं तो नूब नहीं हूँ। अरे आप नूब नहीं हो, आप फीडर हो। आप बेकार वाहियात घटिया, ठीक है? बट ये इस फाइट के अंदर देखिए क्या मैं ओजी से खराब खेलता हूँ? हाँ बहुत ही। देखिए ऑल जोक्स असाइड, जो यहाँ पे हम टाइनी की फीडिंग देख रहे थे ना, दैट्स यू इन नॉर्मल लॉबीज। टाइगर ने अलग ही, मतलब सही बताऊं, व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट द वेरी फर्स्ट टीम, ओजी ने किसको हराया था? 2-0 हराया था। उस टाइम टाइगर प्लेड वेरी गुड। पिछले 2-3 गेम्स के अंदर आई डोंट नो अबाउट द ड्राफ्ट और क्या था, मजा सा आई ऑलवेज फील कि ये जो ड्राफ्ट था, जो इतना अर्ली पिक हस्कर रिवील कर दिया, अरे हस्कर का कोई प्रेजेंस था ही नहीं इस गेम में। स्टार्टिंग ऑफ द लेन से ही डोमिनेट हुए जा रहे थे। ब्लड सीकर के साथ उनकी तो जिंदगी खराब हो रखी थी जी। और कोई ऐसा एक पॉइंट नहीं था। आप देख सकते हो उनके स्टैट्स की तरफ नजर डालिए, 4-7 और टाइगा 1-12 और माटू को जो अर्ली फार्म, हमको पता है कि यू नो ब्लड सीकर इफ ही गेट्स दैट अर्ली फार्म मिड गेम तक कितने ज्यादा डेडली हो जाते हैं, सो डिफिकल्ट टू डील विद। And सारी की सारी फाइट्स में everyone from the OG side was involved, most of the people। जहाँ पे KD देखे तो सब की 25 के ऊपर चल रही थी, including KDA, sorry, not just KD, KDA। तो means the involvement was there, the support was there, team play काफ़ी अच्छा देखा, early stages पे काफ़ी interesting gangs देखने को मिले। And
जैसा आप लोग बात कर रहे थे कि ओजी को, सॉरी टीएल की बात कर रहा था मैं, ओजी को जो है लेट गेम तक जाने की जरूरत थी, नहीं जा पाए। गए तो थे बट बहुत ही खराब हालात। कौन से लेट गेम था? कभी थे भी ऐसा कोई एक फेज आया नहीं था? अच्छा नहीं ऐसा कोई कौन सा फेज आया था जहाँ आप बोल सकते हो कि ओजी यहाँ से कम बैक करेगी? एक जगह बता दीजिए। आपका सपोर्ट नहीं था विक्सिस उनके पास? वो हमने ना ज्यादा डिले कर दिया है। एंथम अगर तब गा लेते तो। देखिए मैं तो बोल ही रहा था पहले गा देते हैं। Guys, I think you guys don't want to listen to me. अब फोकस करते हैं नेक्स्ट BO3 पे, that is between Aster and PSG, the Titan, Chinese Titans. और पिछले 4 साल से चाइना इंटरनेशनल नहीं जीत पा रही, चाइनीज रीजन की टीम जो। So I wish कि इस बार कोई ना कोई एक ऐसी टीम हो। I'm rooting for PSG because this time I think Ame deserve more. सेंटिमेंट्स हटा के एस्टर के लिए क्यों नहीं रूट कर रहे आप? Because यार 2018 से लड़का रगड़ रहा है आमे, स्पेशली आमे। और लाइनअप चेंज हो गए बट उसकी परफॉर्मेंस में फर्क नहीं आया। आपका पड़ोसी तो इम्प्रूव करना चाहिए ना। मेरा कौन सा पड़ोसी है? 2018 में वो आई रिमेम्बर जेरेक्स का अर्शेकर का इको जब वो टेरब्लेट कर रहा था। 19 में वो लिक्विड से हार गए, सेकंड रनर अप। 21 में लाइक मैं कितनी बार बताऊं, आमे इज अ लेजेंड मैन, आमे इज अ लेजेंड। लाइक द प्रोड्यूसर का कॉल आया है कि इंटरव्यू चल रहा है, बकवास बंद करें, इंटरव्यू पे चले। It's a little more complicated than that. I mean, of course I'm happy, but I felt like they didn't really get to play their best. I think the pressure kind of got to them in a way. I feel like the OG we played maybe 1 month ago felt a lot stronger than this. So I'm sure I know how it feels like to lose without playing up to close to your full potential, and that feels really bad. So I feel bad for Tommy, but I'm of course super happy we won. You never know what to expect. We of course respect them a lot, so it was in some way easier than I thought it would be, But yeah, I don't know, happy. We have another game today, so I'm trying to not get too relaxed, I suppose. Yeah. There is a weird sense of having to balance everything, and I know the confidence level has to be tough when you start in upper brackets, and then you've got to get knocked into lower bracket. How did you guys, it feels like you're playing back to your swagger. How did you guys kind of regroup as a team to do that and play so well? I mean, I think the best we played was probably during the LCQ for like qualifying to TI. Yeah. I think these games were better. I think our games against Aster, we were a bit timid, pressured maybe, a little scared. I think they're obviously a good team, and every team has like strengths and weaknesses against each other. How we bounce back, I don't know. It sucks to lose, and you kind of do like some more soul searching. There was a lot of like trying to realize why we lost against Aster in such a poor manner, and to apply like things that we need to do better in the other series. I think against Entity it was not as clean as it was today, so hopefully we'll keep like the trajectory upwards. Awesome. Well, I thank you again for talking to us, and thanks for always showing why Dota is so amazing. You're like happy for yourself but sad for your friends because you know what it feels like, both sides. Yeah, I mean, I'm more sad for a team I know could do better, I guess. Yeah. I mean, for Tommy too, but like the rest, I don't know. Who cares about the rest of them, my guy? Yeah. Thank you so much. We'll see you again in just a little bit. All right, thank you very much. Back to you guys. Thanks, Casey. Yeah, Liquid inch closer to making it into the finals weekend. They've still got one more match coming up later today against Thunder Awaken. But now we're going into a all-Chinese affair, and this is going to be very interesting. I have a lot of experience, love it over there. I've always had a good time in China. So please welcome out the first team. It's PSG.LGD. PSG.LGD are going to be taking on Aster as they come out to the stage. Winning this will put them into the finals weekend. But as I said, their opponents are going to be a tough one to beat. Here come Aster. So far have had a flawless tournament until yesterday's loss versus Tundra Esports.
Let's see if they can pick themselves up and go back with a little bit of momentum. But of course, they're playing a team that they are very, very familiar with. And talking about familiarity, Sheeped, what have you got for us? All right, I have a little story. So back in Tour 2 of the DPC, Aster 2-0'd LGD. And in a post-game or post-series interview, Pichu, the POS5 of Aster, was a little bit flamey. He used a rude nickname to refer to Ame, and he said he looked forward to LGD coming back and stomping them 3-0. So we go forward to the regional finals of that tour, and LGD 3-0 them. And it was very funny, and Ame comes out in this interview of his own and is very cocky. And this is a guy that when he speaks in his pub games, people call it a medical miracle because he just doesn't speak. And he comes out here and says, yeah, we gave them those 2 wins in the DPC. He knew that they could beat them, and he wanted to remind them who they were after they got a little bit too cocky. And it was just a really cool show of personality between these 2 teams that I like to see out. And like Pichu himself on Aster, he is a bit of a troll. This is the guy that during the Arlington Major, he was the one that called Amar ATM. And this actually even has links to the Chinese community where Chinese fans, when Ame starts to feed, they will refer to him the same way, ATM, but with an E on the end to be closer to his name as well. So I love seeing that kind of banter and trash talk come a little bit to the stage. Do you think it's kind of nice, fun trash talk? Oh, yeah. Or do you actually think these teams are like, you know, we actually don't like each other that much? No, there's no way. So these 2 teams are definitely true rivals. Like, having worked Chinese DPC for like 2 years now, they're definitely bitter rivals up on top. At the same time, though, like, they've been instructed on how to conduct themselves on the interviews, which is also very interesting. Like, they actually had some lessons on how to present the team and everything else. So it's even more interesting when Shippo shares the story in which he's a little bit banterish. But also, it's like then we follow through. Like I was speaking to Leon Arthur. He's like the Western Dota community's connection to like the Chinese memes and stuff. And basically, we're in agreement that this isn't kind of a happy series for China at all. You know, the fact that you have Aster, a team that it used to be a little bit more memed on in the scene, but recently with their performances and kind of stepping up at TI, they've kind of gained the respect of the community. PSG, Faith retiring after this one potentially. They don't want to get them knocked out, so this, what could have been more of a meme game, at least in the community and the current kind of meme game, it's like, no, this is a Samba series. This is like, we don't want anyone to go out. We want them both to go as far as they can, because they both deserve, at least in their community, to get to the finals. All right, and I got good news for you guys, by the way. It's been told we can't find Sunsfan and Cinderin, so we might be doing the draft. It wasn't this schedule, but it's improved my day. I'm sure that I'm sure they actually might be found, but we will be going and doing the picks and bans here. And I know you really wanted to do that, Sheep, because you've been following these teams a lot. But going to PSG.LGD, what's the kind of storyline with the players? Because there's an uncrowned king, people say. Yeah, the uncrowned king called Ame, or Atmi, like Shippo said sometimes. Like, he's always getting close to this TI championship. He's always getting close to the crown, to the ages, but it kind of eludes him, at least in the last couple of years it has. Is it 3 times? He's been 3 times finalist, but never won. Yep. TI. So close, yeah, far. And we also have another kind of retirement storyline here with Faith Bian. Exactly. It's the fact that potentially this team, I think they have the most games played as an active 5 roster. Beast Coast was second to that. Of course, they're not like top. I think first place is like the Loader Alliance days back in the day. But the fact that this team, they've been together for so long, they've been trying to find that success, and like they have had incredible success, just not got that Aegis. You ready? I'm ready. I'm ready. Here we go. It looks like we're ready for game number 1. PSG.LGD versus Team Aster. Game 1. PSG.LGD's turn to ban. Oh, hello. Sunsfan here with Cinderin, and we got my boy Celery here from Gaming Gladiators, who I don't believe you talked about this in the previous cast, but you'll be donating all of the money that you're making at TI for an animal sanctuary. This guy is legit human being. Animals are better than humans, right? I think we're also animals, right? No. It's going to keep it equal. He's an animal, that's for sure. We play Dota. That is very true. As we have a very important match, there's only going to be one Chinese team left at TI after this series, General. What are your thoughts on
these two juggernauts going at each other? So, inside the Chinese region, just internally, I want to say the last year and a half maybe, most of the time Aster has been one of the juggernauts, and then when they've come on the international stage, they've kind of failed to produce the same results that they have back home. So in a way, the fact that Aster have picked up international steam and they're doing better in international competition, and the fact that they're facing a Chinese team here might be good news for them. It might be a good matchup because against LGD they've been looking pretty solid online for most of the time. Yeah, LGD also played one series today, so that could be in their advantage. They're already warmed up. They're feeling in the zone today. But if Aster prepared well, maybe they use the rest. So we'll have to see what the draft brings. If you were Aster in this instance, how would you prepare? Would you be like, would you literally just pub beforehand? I would let the players just play a pub, maybe a scrim, just to relax a bit, just warm up, and the coach can look at the game. I don't think the players should look at the game, because watching takes a lot of energy. If you're watching seriously and you're looking at what is happening, and then you're also tired, but you didn't even play. Yeah, so I don't think that's a good plan. I think you should chill. 10 seconds just be ready when the game starts. We get to see Primal Beast, who has been banned seemingly every game for the most part. Is he still as strong as we thought he was, or is there a reason he's getting through? Well, he was very good yesterday when you had Ace play it, that's for sure. That was a pretty standout performance from him in that game. Despite Emma, did you have it twice? We had it only once. You had it only once, and that was the game that it was kind of counterpicked too, right? They got multiple counterpicks against it, and you still made it look really good. So yeah, the cool thing about this hero is you can always flex it on offlane and mid, and even on 4 if your players can play it. And this hero doesn't really lose many lanes, unless it's almost impossible to pick lanes where this hero cannot farm. You can almost always farm. You can always play post 4 and roam. This hero, it's just very, very nice to start the draft with. Very old school combo in the Shadow Demon Lina that used to be the old Dota 1. Actually, it was Sven Lina as well, the two of them. But you get the disruption into LSA. I mean, an immediate Ember pick, despite the Demonic Purge being able to purge the Flame Guard. 10 seconds. How much do you think LGD are going to be playing into the idea of Primal Beast as a flex? Do you think they're going to hold it the whole way until the end? Or like at what point do you feel like the matchups you see are enough information? Like right now I look at the Shadow Demon Lina, I'm pretty happy as Primal Beast for now as a core. Do you think there's any concerns yet? Because usually you don't start with 2 cores, right? If you're locking it in like that. Yeah, I guess they're very confident in their Ember, and it is good against these 2 heroes. He's gonna have a free lane against the Lina for the most part if he plays it well. But with the flexing of the Primal, they don't have last pick, so they'll probably hold it till their 23rd pick. They'll just see if they put it off lane on 4. I'm not sure if they've run it on 4 before, but Xingqiu seems like a guy that would enjoy this hero. He played Spirit Breaker earlier today. It's like the same hero, just faster. Not quite global. Not though. quite. Yeah. They're actually very different, but they both charge, so we'll say it's the same hero. Well, I think Primal Beast doesn't actually speak a language, to my knowledge. That's also true. Spirit Breaker does have actual voice. Do you know who wins the charge, though, if they charge against each other? Ooh, that's a great question. The Primal wins. Really? Yeah. Huh. Because it stomps this guy to the ground. Got bigger AoE, right? Well, his body is bigger. It makes sense. Yeah, physically speaking. Yeah, Dota's known to be really realistic in that way. Absolutely. That's true. Yeah. So we're going to see Silencer being taken out along with the Brew and Lifestealer. Lifestealer kind of this hero that has had a bit of a resurgence here at TI. Well, I feel like the most part of the year it's been kind of ignored. Do you feel like this is semi-recently? Is this kind of a tell that they want the Primal to be a core? I'm assuming this is one of the better matchups against Primal. You have Rage against Trample. Primal generally gets very tanky, so Feast becomes valuable later on. And I wouldn't say Lifestealer is a particularly good hero against Ember, right? So it does seem like they're maybe trying to set up for that, or that Lifestealer maybe counters something that LGD are planning for second phase. It does look like they're banning for it to be offline right now. They could just still keep it open, but there are not that many post 4s they would probably want against this SD Lina combination, so it would make sense if they just pick some hero like a Tusk in this second phase, and they don't want to leave it till last when most of these heroes will be banned. Speaking of force, there's a couple of really popular heroes that have been totally ignored here. Both Nyx and Marcy getting no love. Marcy fully ignored. Marcy has been first phase picked or banned in most games we've seen. And it was interesting to see Aster opt for the Shadow Demon Lina combination, because I feel like when I think of Boboka, I think of a roaming player, right? That sets up plays and is super effective. He's very known for his 4 Ricky when that was a thing, Earth Spirit.
Marcy should be perfect for this player, like as a stereotype, right? So the fact that they're not doing that into Primal, maybe they think it's a bad matchup. Yeah, they got the chance to still pick it up here with a ban. Yeah, they could. Now Morphling Ench, the last two bans with the second phase for Aster and Mars for PSG.LGD. We're going to see Murat. So more setup for the Shadow Demon. Interesting. So you got the arrow, you got the LSA, you got, doesn't matter what lane they go to, as long as Shadow Demon's there, they can set that up. Something I feel like I've been noticing over the last, I want to say 2 days, is I think teams are learning quite a lot from especially Tundra. I would say Tundra has been playing these lineups that have a lot of skirmishing potential with like 2-3 hero combinations that just have stuns, have burst, and also have the scaling. Tundra was one of the only teams to play Chaos Knight, for example, as a carry because they just seem to utilize it so well to enable their other players by having him on that carry hero. And when I look at this Aster lineup, it kind of reminds me of something that I feel like I would see Tundra pick. If their next, like let's say their safe lane carry now also has a stun, there's just so many ways that SD, Mirana, and Lina can find moments around the map, as long as you don't compromise on teamfight too much. Yeah, these heroes are all very good as well against the Primal. I think at this point you might want to think about putting it on 4 because it's going to be quite hard in these lanes to get on top of anything. Visage, okay. It looks like they will lane the Visage of the Primal. Well, when you guys were drafting, I mean, Cinnamon brought this up earlier, but you had the Primal Beast hard countered, and it was an early Primal Beast, and you still played it as position 3. What was the thought process going into that? Did you just feel comfortable doing it, or... Because when we looked at it, we're like, wow, this Primal Beast is going to have a really hard time. And he did initially, and then he literally took over the game, it felt like. Yeah, I don't remember exactly what we were thinking. I think the main thing with this hero is he's always going to have a pretty decent lane, even if you try to counter him, if he's not countered into the lane. And yeah, I'm not sure actually. That's the interesting part where I don't do the draft and my coach does it. I was just chilling a bit, waiting to see what happens, and then, it's offline. Okay, good to know. There we go. The inside dynamic there for Gaming Gladiators. So we are going to see the Pango come out, and Aster will save their carry pick for last. This is usually, if you feel like at this point when you see Visage, Disruptor, and Primal, that you can kind of lock in what type of lane at least LGD are playing in the offlane, which we both think is going to be Visage Primal depending on who gets the farm priority. We don't know that yet. This did feel like a spot that you could have picked your carry in, so why do you think they opt for Pango first? Yeah, that's a good question. I guess they're very confident on this offline Pango, and they feel like it's gonna get banned if they don't pick it up now. And it is a pretty good Pango game. If he gets going, if he has a good start, maybe he can even go for a bit more core build with the Diffuse instead of the Flats on offline. Very quick bans here from LGD. They knew exactly what they wanted to get Keep in mind, these two teams have played a lot against each other throughout the year. Maybe not that much recently, but I'm sure they have tons of scrims as well behind the scenes. And I wonder who that's actually going to benefit, really. Because LGD, obviously the team that has more success on the international stage. Yeah, I think a lot of the time the intra-regional experience kind of fades in comparison to the meta of the tournament itself. I think most of the time it's about who adapts better to what proves to be powerful in the events that you're at. So I personally don't put very much stock in, let's say Aster had an insane win rate against LGD online for the rest of the year. I don't think it's that important. What's important is how these teams have looked in their last few series, how they've adapted to what other teams are throwing at them. And when I look at this Aster draft, I don't see Aster picking specifically something against LGD, right? They're just mentioned this hero. Yeah, now that my goodness is not something I would have expected. What position is this Ricky? It should just be carry. Probably carry. I think so. We're not going to see the weird like shard into whatever the hell he do on this hero. I mean, he might buy it later. It is a pretty cool Ricky game if he gets on top of any of these backliners. Smokescreen is pretty damn good this game, no doubt, especially against Pango, which means you're going to need to buy 4 staffs, which you wouldn't want to do normally. Wow. In the past, we've sometimes seen teams pivot from mid-Ember and putting it safe lane, but I don't think I've seen that a single time this tournament. Usually it was paired with Magnus when you did that, because you could compensate for Ember's lower levels by giving him Empower. Do you think there's like any world that this Ricky is not safe lane and Ame's playing Ember? There's not, right? Like it has to be Ame on the Ricky. There's definitely a world, but not this world. Because that gives Aster quite a bit of information for this last pick, right? And they're going to opt for a Drow. This is a hero that Ricky can relatively easily get on top of, actually. I think it might be a really rough lane for this Drow and SD, I imagine they paired with. Primal and Visage. I think they might destroy this lane.
to form Primal on Jinkyu, so they will give the farm priority to the Visage. I'm excited to see some Ricky. Yeah, I mean, me too. This hero is super hit or miss, in my opinion. I don't think I ever see a game where I'm like, oh, this Ricky did okay. Like, he either sucked or he crushed, you know? It's very, very polarizing hero, especially on a professional level, because he can fall off really, really hard. It's either going to catch on and more teams are going to pick it, or it will literally never be picked the rest of the game we see in the main event, yeah. Is this the first Ricky game of the main event? I think it is. I mean, surely. I'm pretty sure it has been picked in groups, but I want to say it's been less than 5 total games. So. Oh, you probably just didn't see it. Oh. Well, Celery, appreciate you coming on, making fun of Cinderin as always. We really appreciate that. Gonna have the rest of the day off, my friend. Thank you very go much. over to Mr. Sir Action Slack, so I believe it's with Lan M. Absolutely, we have, ladies and gentlemen, please put your hands together for Big Draft Lanham. How you doing? And Jen, our translator right there. So, you've let through Primal Beast, something that many are not brave enough to do. Was that part of your plan? Did you expect them to grab that instantly? 首先欢迎有请BP 大神国土，然后就想问第一局你们放出了这个兽，然后这个兽也是本届 TI 一个很兽，就是每个人都想要的一个英雄，已经很少有战队敢把它放出来了。你这边这么采取这样的一个 BP 的行动，是专门有计划来针对他了吗？还是怎么说？肯定是讲好的，因为有些东西那个不好说嘛，对吧？就是有些东西能放，有些东西不好放，就选一个放嘛。Well, it was all according to plan. Obviously, for us to make a draft like this, we obviously would have some sort of strategy against it, and we can't reveal it for obvious reasons as well. But you know, sometimes it's all about picking the lesser poison, so to speak. I see. And very quickly, Ricky, did you see that one coming? 最后一个就是力挽，你有预测到会选这个英雄吗？没有。Absolutely not. All right, well, we'll see if it works or not here. All will be revealed. Many puns on this one as we throw it to our casters. Thank you, sir. Alrighty, ladies and gentlemen, एक और elimination match lower bracket का PSG.LGD versus Team Aster. मैं हूं सुपर जॉनी, मेरे साथ मौजूद है Fixes, and for the first time ever on the international Hindi broadcast हमारे साथ जुड़े हैं, जैसा मैंने कहा था, one of the best Dota2 players of India at one point, Mr. Arrow. कैसे हैं आप? That was one hell of an introduction, so thank you, Johnny. And yes, this is my first time, so good luck to me. Talking about the game. PSG versus Aster lower bracket match. Aster lost to whom? Aster lost yesterday to Tundra. Yes. Interesting matchup. So squishy heroes hai काफी Aster के Dro carry, mid lane Lina I'm expecting, and off lane Swashbuckle wala aadmi, whatever his name is. Pangolier. Ricky would be support. What do you guys think about Ricky? Is he going to be a core or? डेस्क ने भी उसके ऊपर ऑलरेडी अपना विचार प्रकट कर दिया था कि ये जो रिकी होने वाला है, इट्स प्योरली प्योर पोलराइजिंग. चले तो चांद तक, नहीं तो रैट की आवाज में, नहीं शाम तक. But I think at this point, Ricky Maru, who's gone for this? Ricky Maru, maybe kind of. So he has a Quilling Blade. It's a carry Ricky. Yeah, he has a Quilling Blade, so Ricky is a carry. Yes. Ember is mid, or I'm expecting a Visage plus. 30 seconds to battle. क्या नाम है उसका? Primal Beast. Primal Beast, yes.
should be off lane. So Ricky के साथ will be Thrall, Disruptor, whatever you call him. दोनों टीम्स का गेम प्लान यहाँ पे आ रहा हो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? लाइक फॉर PSG/LGD क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए टू गेन एडवांटेज? So if you look at the ward placement, definitely Draw Ranger को बहुत सारे stacks चाहिए होंगे. So it has been warded already. Top side अगर आप देख सकते हो तो they will try to block as many stacks as possible. Bottom would be dead, probably Ricky and Disruptor, I guess. So, no, Disruptor is going up. So, let's see. Interesting. I think Arrow यहाँ पे PSG/LGD will try to get a good early start. And जो इनका lineup है, just wait for Visage familiars to come up. और उसके बाद they can start to snowball because अगर लेट गेम ट्रांजिशन जाता है, they really need to have the Ricky farmed. क्योंकि looking at Aster, अभी थोड़ी देर पहले we have seen this combination, Lina and Rao, where it was such a deadly one. इतना ज़्यादा डैमेज आउटपुट आ रहा था. But we have seen कि Lina बहुत rarely अपने lanes हारती हैं. And two of the finest mids, nothing to say. और ओरी के बीच में मैचअप और CSing के मामले में भी दोनों ही equally contested हैं. So in ideal situation, it should be Lina who should be winning the lane. और बात करें Aster की, so उनके पास एक काफ़ी अच्छा combo है disrupt करके arrow मारना and then you have a draw as well. So जैसे आप बोल रहे थे कि it should be PSG कि उन्हें dominate करना होगा. I think it's going to be the other way around. But as you can see, Visage is going on to Shadow Demon. And not just that, like even Aster के पास they can follow it up with a Lina stun also. तो variation बहुत सारे variations तो है ही. And counter initiations भी रहेंगे और हम अपने producer से दरख्वास्त करेंगे थोड़ी सी जो PGM sound है वो लो कर दें. और यहाँ पे already शुरुआत हो चुकी है. यहाँ पे Y काफी ज़्यादा damage लेते हुए. But he'll live. Disruptor wasted his salve and उसने सारे tangos भी खा लिए. So it is going to be hard lane. He has to refill himself and probably support Ricky. So काफी interesting होने वाला है. The next 5 minutes at the bottom lane. बहुत ज़्यादा. I mean, विशाल आप मुझे ये बताइए कि what are the probabilities of Ricky trying to win this lane? क्योंकि यहाँ पे I think Aster उनके ठीक गले के नीचे ही रहेंगे, मतलब सांस नहीं लेने देंगे. So क्या-क्या करना चाहिए इस समय so that Ame has a really good time in the lane? So the fastest thing I think is if diffusal is the way to go for Ricky. As soon as possible. Direct boot लेकर भी Ricky direct diffusal जा सकते हैं. But if he wants to go for a power threat, so that is also an option. For draw, it's going to be interesting. So draw को अपने आप को बचाकर खेलना है basically. While Shadow Demon तो है उनको बचाने के लिए, but it is not going to be that effective. And as you can see, a very low armor hero. तो 3 मुक्के पड़ते ही उनकी HP आती. And same goes with Draw Ranger as well. तो creep stats अगर देखो तो both are evenly matched. Draw and Ricky are equal. Expected था कि Lina would have the upper hand and she is having, but सारे bottle charges जा चुके हैं and she has to refill her bottle. उसके बाद she'll be fine. Bottom lane, they're going for a kill. First blood for Aster. Like I said, कि no consumables, so काफी दिक्कत होने वाली थी and it was expected. But अब जब वो return आएंगे, तो he should have a lot of things for himself. Admirana exhaust हो चुकी है and Pango के पास भी I don't think so कुछ है सामान. इस मोमेंट पे आई थिंक जो शुरुआत मिली है एस्टर को ज़रूर यहाँ पे कैपिटलाइज करना चाहेंगे बिकॉज XSS गेटिंग दैट फर्स्ट किल, फर्स्ट ब्लड. नाउ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल फॉर लीना इन द लेन. ओरी अपने आप को जीवित रखना चाह ज़रूर रहे थे. बोबोका आए थे की मदद करने, बट यहाँ पे अर्ली ऑन लीना को गवा देना पड़ा. तो जो सीएसिंग एडवांटेज था, जो नेटवर्क यहाँ पे थोड़ा बहुत बिल्डअप हो रहा था, वो चला गया.
I think the only silver lining is capturing this rune. I'm surprised कि उन्होंने मिराना को TP करवाया mid and not Shadow Demon because Shadow Demon बचा लेता उसको. So pretty surprising. I'm sure कि he wanted to be with Dro तो and जैसे लीना मर जाती है तो when she comes back she will be refilled and she can get the items as well. And respawn timer इतना ज़्यादा नहीं था so they were okay with it with the trade और first blood नहीं था right so. One thing we have witnessed is Monet has been pretty consistent, Johnny. I mean, हमने most of the matches में देखा है he's had like a very stable farm and बात करते ही करते यहाँ पे Shadow Demon has been finished off, but trade off में Zinkyu might have been taken down, but a very interesting pause, a very crucial time. जानना चाहता हूँ ऐसा क्या technical problem हो गया? नहीं, ये BM नहीं है. जो कर रहे थे पहले OG और Liquid वो होता था BM गेम नंबर 1 हर गैंग के बाद पॉज कीजिए इमोट स्पैम कीजिए एंड देखिए कुछ तो लिख रहे हैं कुछ तो इशू हुआ है एंड मैंड्रिन तो मुझे समझ नहीं आती का इशू है ही इज टेकिंग ऑफ हिज हेडफोन्स जी हाँ क्योंकि ये जो अभी टीआई का जो व्यवस्था किया गया है सुनने में तो काफी चीजें मिलती हैं आप लोग बूथ्स के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं आई वुड से स्टेज डिजाइन इज अमेजिंग क्योंकि जो स्टेज है प्लेयर सिटिंग एरिया इज रोटेटिंग स्टेज तो जब एक गेम चल रही होती है पीछे वाले सेक्शन में दूसरी टीम्स ऑलरेडी जाके बैठ जाती हैं एंड देन व्हेन द मैच इज स्विच अप अरे जॉनी मेरी जान कभी आप रेडिट का भी सफर करके आ जाओ कभी रेडिट पे हर चीज सच नहीं होती फिक्सेस आप बड़े कब होंगे क्राइड ये बात हेडफोन पहन के बोल दीजिए बिकॉज़ दिस इज अ पीएस नहीं देखिए इंटरनेट की बात नहीं है यहाँ पे जब प्रोफेशनल प्लेयर्स भी ट्विटर पे ट्वीट डालते हैं अपने वेरीफाइड आईडीज से ठीक है अरे हम तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं हमने कुछ बोला क्रैट आप ये जो मनगढ़ंत बातें बनाते हो मनगढ़ंत प्राइमल बिश तो डेड है यहाँ पर क्योंकि उस पे 2 चार्जेस है शैडो पॉइजन का एंड प्रोबब्ली 1 हिट फ्रॉम Draw Ranger should do the trick. Yep. But Visage can probably go for a kill on. So when अगर Draw Ranger उस पे अटैक करती है तो सारे creeps Draw को मारेंगे and नहीं यहाँ तो बोल सकते हैं क्यों रोक रहे हो ऐसे whatever and then if I'm sure कि Visage के पास first kill नहीं होगा so it's Dota be slowed. यहाँ पे हम बट वार्ड्स की बात करते हुए फिक्सेस हमने जैसे स्टार्ट में देखा था कि जो डायर जंगल है वो इन्होंने वार्ड कर रखा था वो डिवॉर्ड हो चुका है ऑलरेडी सो इट इज एक्सपेक्टेड एंड शैडो डीमन इज अ वेरी गुड स्टैकर तो काफ़ी स्टैक्स देखने मिल सकते हैं हमें इन नेक्स्ट 3-4 मिनट्स एंड 10-12 मिनट्स के आसपास ड्रो से क्लियर करते हुए दिखेगी या तो लीना क्लियर करते हुए दिखेगी बिकॉज दे वुड वांट टू स्नोबॉल लीना अ लॉट so that Dro को space मिले and Dro farm कर पाए but again they don't have the heroes जो burst down कर सके heroes को PSG के side पे so late game transition अगर आप देख रहे हो where we cross that 40 minutes marker and this is something हमने इसके बारे में discuss भी किया था but finally game unpause हो चुका है and जैसा already premeditated था कि यहाँ पे उनको गंवाना पड़ेगा primal beast so quite an interesting lineup and ये सब चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है बट फिलहाल के लिए शी इज ट्राइंग टू गो फॉर इट थोड़ी बहुत स्लोस के फ्लॉग्स हो रहे हैं इट्स जस्ट मे बी फ्यूअर एसेस एंड देयर यू गो गेट्स दैट किल एंड यहाँ पे मोने के लिए हो चुका है ड्रीम स्टार्ट और बहुत ही बेहतरीन साइलेंस एंड थोड़ा सा पुशबैक भी किया सो व्हाट एन इंटरेस्टिंग प्ले फ्रॉम ड्रो रेंजर उसके बारे में बाद में बात करेंगे फाइट हो चुकी है ग्रेट सेव बाय शैडो डीमन बट लीना बच नहीं पाएगी यहाँ पर 2 seconds. Learn from your mistake. Good gank by. अब ड्रो की कुछ बात बता रहे हैं yes I was saying कि ड्रो के साइड से इतना अच्छा एग्रेशन देखने को मिला so usually when you attack a hero तो सारे creeps आपको मारने लगेंगे so ड्रो रेंजर अंदर से झाड़ों के अंदर से आई and mid पर फाइट करते हुए फिर से and फीड करते हुए Oh, but beautiful. Bobuka coming for the rescue. Nothing to say.
जिंदा तो है बट इट इज जिंक्यू प्राइमल बीस्ट लिया है एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्राइमल बीस्ट इस बार वी हैव सीन मिड प्राइमल्स वी हैव सीन ऑफ लेन प्राइमल्स आई थिंक मेन स्टेज पे पहली बार हम लोग P4 प्राइमल देख रहे हैं So they know कि उन्हें लीना को स्टॉप करना है because if लीना starts snowballing तो she will kill everyone. ड्रॉप के ऊपर कैंप होते हुए there's no way she survives. Definitely not. Glimpse आ गया और this is like kill to visage. जी हाँ और I think एक point पे you know once you hit that level 6 marker familiars भी आ जाएंगे visage suddenly becomes a threat. Need those early core items and एक बार आ जाए and then PSG they will be trying to start engaging in some early ganks but वही बात है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा stall कर सकते हैं for the cores of Aster. Very nice word by PSG.LGD again कि वो लीना का stacks रोकने की कोशिश करेंगे. Bottom tower goes to Aster expected. आमे का काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है despite you know being harassed early on. He's recovered and Dro being in the midst of fight every single time. फिर से एक और fight की शुरुआत हो चुकी है. यहाँ पे आज चाहते हुए मंचते हुए जिंक्यू सहायता करेंगे. Casual लगुना ब्लेड. जी हाँ और ओरी की तो जान ले रखी है विशाल एंड यहाँ पे किस प्रकार से अब टीम आस्टर को you know प्ले अराउंड करना पड़ेगा. आई थिंक जैसे आपने कहा they will have to focus on getting लीना the stacks ancients जितने भी stack कर दो जंगल जितना स्टैक कर दो थोड़े बहुत फार्म रिकवर उनको करना ही पड़ेगा बिकॉज आई हैव सीन आस्टर के अब तक जितने गेम्स हुए मेरे को ज़्यादा कुछ कंप्लेंट्स तो कभी मोने की तरफ से आए नहीं बिकॉज इफ दिस मैन गेट्स फैट देयर इज नो स्टॉपिंग हिम बैक. Yeah, I think they should Aster should concede this tower and go for mid instead. इससे Ember will have to go somewhere else and at the same time they also get a tower traded. That tower money is really important for both the teams. तो टावर्स आर रियली इम्पोर्टेंट. ये नहीं करने देंगे इसे. जी हाँ एक एरो या फिर एनी सॉर्ट ऑफ इनिशिएशन बट यू कांट स्टॉप नथिंग टू से एट दिस पॉइंट क्योंकि हैज़ दैट लग्जरी ऑफ गेटिंग रेमनेंट आउट. देखिए यहाँ पे इंस्टेंट रेमनेंट आउट करेंगे कोई परेशानी नहीं होती भी. दे नीड सम ऑफ दैट बर्स्ट डैमेज और यहाँ पे बर्स्ट डैमेज इन द फॉर्म थोड़ा टाइम लगेगा just for the players to come online, especially when Lina has been shut down. A fight between the two carries. Mone against Ame, and Mone is having such a tough time, especially जब Y आ जाएंगे थोड़ी देर में स्पॉट होते हैं तो ग्लिम्स का इस्तेमाल भी हो सकता है. टॉप लेन पे एक और फाइट छिड़ चुकी थी ऑलमोस्ट. 4 प्लेयर्स देखिए यहाँ पे एस्टर के साथ साथ घूम रहे हैं एंड ये कोरियर कहीं नहीं जा रहा. 100 गोल्ड तो एटलीस्ट वो विसाज का It's a familiar. कितनी देर तक ऐसा स्ट्रगल रहेगा यहाँ पे PSG का? For how long will they be like this? MLS nothing. Just what I need. अभी गेम में एस्टर का डोमिनेशन काफी ज्यादा होता हुआ हमें नजर आ रहा है. पैंगोलियर नेटवर्क में टॉप हिट करते हुए बट उनके पीछे के जो 3 हीरोज हैं वो तीनों के तीनों हमारे रेडिएंट्स एके PSG.LGD के हैं. एंड अगेन मैप पे जैसे विशाल बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इस वक्त एस्टर ने बना रखा है टुवर्ड्स मिड टुवर्ड्स बॉट. टॉप लेन है जहाँ पे किसी तरह से PSG.LGD थोड़ी सी रिकवरी मेंटेन करके चल रही है लेकिन अभी गेम थोड़ी देर में इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स विल ट्रांजिशन इनटू फ्रॉम PSG. इट विल बी गुड कि शैडो डीमन मर जाए भी बट सो दैट ड्रोन आ रहा है बट ओह ये देखिए पल्वराइज कर दिया गया यहाँ पे मोने की. तो आई थिंक आई डोंट सी यहाँ पे जिंदा रहने वाले हैं. कोई एस्केप मैकेनिज्म नहीं और यहाँ पे देखिए नॉट द आइडियल प्लेयर दो बट वाई को थोड़े बहुत फार्म तो मिल ही जाएगी. आई वुड हैव वांटेड टू सी आमे गेट दैट लास्ट हिट बट आस्टर की जान खा रखी है अभी PSG.LGD ने. मैप कंट्रोल भी है यहाँ पे उनके स्टैक्स डिनाई करा जा रहा है. नथिंग टू से इज हैविंग अ लवली टाइम एंड एज ही कीप्स ऑन ट्रांजिशनिंग एंड एज लॉन्ग एज द लीना इज गेटिंग शट डाउन एस्टर को कुछ ना कुछ एक रिस्पांस के साथ तो आना ही पड़ेगा. सो अगर आप मैप देखो तो वो लोग काफ़ी मार्किंग्स कर रहे हैं. सो PSG really wants to push mid lane, so they might just gather around and
I think they're waiting for Visage to come. So ये चीज़ basically Aster कर सकती थी जब PSG top tower ले रही थी उनका, so that they would not have to worry about taking the mid tower later on. अब उनके लिए मुश्किल हो जाएगा mid tower लेना, because the next would be bottom tower for PSG. बॉट पे ऑलरेडी काफ़ी बड़ी वेव क्रैश कर चुकी है, एक और क्रीप वेव वहाँ पे पुश करती हुई नजर आ रही है। बट उससे पहले पैंगोलियर वर्सेस एम्बर स्पिरिट शुरुआत से जद्दोजहद चलते हुए अभी कंटिन्यू। या ये देखिए अब इनको रीजन रून भी मिल गया है एंड ये तो वही वाली बात है, सोने पे सुहागा। वी गेट टू सी अ लॉट ऑफ स्पैम अराउंड, रेमनेंट बैक करेंगे वापस से, चाहे अपना रीजन रून भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइट के अंदर वापस से प्रवेश कर सकते हैं। बट इस समय there is no Mirana. जी हाँ, They have not done the combo even once. So Ember को as expected BKB would be the ideal item, so he is going for that because they have a lot of stuns in terms of Shadow Demon, then Mirana and lot of lockdown Lina as well. तो Ember Spirit once एक बार उसके पास BKB आ जाए तो फिर he is unstoppable. He can just dive into anyone and kill them. Probably someone like a Shadow Demon. Hendrik will take care of draw probably. So yeah. I think Vishal, one thing यहाँ पे Aster कर सकते हैं, you know, just go out on a smoke and try to spot out Ricky, और जैसे आपने बोला disruption into Sacred Arrow. Yeah, but they are heading in the wrong direction. Yep. और आमे को कोई परेशानी नहीं होती हुई लगूना ब्लेड भी चला दिया, बट उतना डैमेज आउटपुट था नहीं। बट इधर फाइट हो चुका है, स्टैटिक स्टॉर्म काइनेटिक फील्ड डाल दिया गया है, मुने की तरफ से डैमेज देने का पूरा प्रयास नथिंग टू से के ऊपर, और नथिंग टू से देखिए वापसी जाते हैं विसाज के सहारे, सपोर्ट भी मिलता हुआ यहाँ पे स्टन हो चुके हैं, रूटेड हैं, और देयर यू गो, मोने गेटिंग शट डाउन व्हाइल द पल्वराइज कम्स ऑन XXS। बैंगोलियर अभी के लिए सस्टेन तो करे हुए हैं, पीछे जाने की कोशिश, बट विसाज के जो यहाँ पे फेमिलियर्स हैं उनको ब्लॉक ऑफ कर रहे हैं, एंड देयर यू गो, ही गेट्स पिक्ड ऑफ एज वेल। टावर के पास गए थे, अब क्या था, कुछ तो सहारा मिलता, कुछ भी ना मिला, और एस्टर देखते ही देखते 3 प्लेयर्स अपने गवा बैठे। So what a smart play by LGD. उन्हें पता था कि लीना ने अपना लगुना ब्लेड यूज़ कर दिया है रिकी पर बॉटम पर, एंड एट द सेम टाइम बिकॉज दे न्यू कि लीना अब टीपी नहीं करेगी क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं, तो दे जस्ट वेंट फॉर द फाइट एंड नाउ दिस इज अ फ्री मिड टावर फॉर देम। यहाँ पे Pango got so unlucky here, he got stuck into this. So yeah, छोटी छोटी चीज़ें एक बड़े स्तर पे यहाँ पे एस्टर को चोट पहुँचाती हुई। अब एस्टर का इस गेम के अंदर कमबैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली सामने जब PSG/LGD हो और वो घायल हो, क्योंकि लोअर ब्रैकेट का अगर PSG/LGD का रन देखा जाए, इट्स बीन ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू फ्लॉलेस, वेरी लेस मिस्टेक्स, वेरी लेस गेम्स बीन गिवन अवे, एंड यहाँ पे इट्स जस्ट द फर्स्ट गेम जहाँ पे एक बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स ड्राफ्ट उनके तरफ से हमको देखने को मिला है, which they have been executing very perfectly. net worth advantage is 2k, but it looks like 4-5k के आसपास अभी तक, because the amount of towers and map control that Aster has lost. अभी सिर्फ उनके पास बॉटम के साइड का कंट्रोल है, which evidently नहीं है, but PSG again going on to Mirana, dust pops up, fall back, stun, dead. Moonlight Shadow was wasted, so I believe कि उनके पास smoke भी नहीं होगा और Moonlight Shadow भी नहीं है अभी, so they have to fight this and probably they will lose once Mirana is back. या तो फिर LGD इसमें बोल देना ulti on, oh wow, beautiful. I think यहाँ पे पूरा का पूरा बैंगोलियर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, just zoning him out, follow up आ नहीं वहाँ पे। Defensive ult from Disruptor, very nice. इस पॉइंट पे I think जो early tier 1s इन्होंने डाउन कर रखे हैं, जो उनकी अगली निगाहें होंगी, जो अगला बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा would be coveted Roshan. Yeah. But it will be a very slow Rosh, and Aster is very good in Roshan fight, so it will be interesting if they go for it. But
they will probably wait for Ember का BK भी आ जाए, उसके बाद they will go for Roshan so that they can immediately push. नहीं तो Rosh ages time waste होगा काफी. Or they could just take a fight against Aster. छोटी-छोटी गलतियों का कहीं Interesting ward, जो डिवॉर्ड नहीं हो पाया from LGD. काफी deep information है on their jungles, and this is maybe what they're looking up to next, क्योंकि यहाँ पे काफी restrict करके रखा है. Yes, they cannot allow Lina to get farm. Yeah. क्योंकि फिर अगर Lina farm हो गई तो she will start killing Disruptor and Ricky. तो and वो होने के बाद once again LGD goes on to Disruptor. There's nothing they can do about it. जी हाँ, XXS का फिर से Rolling Thunder इस्तेमाल तक नहीं करने दे रहे, हालात बुरे कर रखे हैं यहाँ पे. एस्टर के स्वॉशबकल इस्तेमाल किया ज़रूर था बट वापस बुला लिया है, और यहाँ पे पल्वराइज भी. और आई थिंक दिस इज द क्यू दैट दे वर वेटिंग फॉर. मे बी दे कुड थिंक ऑफ दैट रोश फाइट, और यस दैट इज़ वेयर एग्जैक्टली दे आर हेडेड. एंड जैसा आपने कहा था थोड़ी देर में आ जाएंगे, बट ये जो 18 सेकंड का विंडो, यू नीड दैट Pangolier कमिंग इन, क्रिएटिंग ऑल दैट chaos. And the BKB comes in. Yes, BKB भी आ गया. Perfect situation for team PSG.LGD to engage in. और यहाँ पे मिराना का arrow भी आया था. Help करते हुए. Yes. No, it hit Primal Beast, right? Wow, beautiful sentry once again. Moonlight Shadow is on. They realize that Aster is very good in Rosh Pit, so they don't want to risk it. Comes back, smokes, but they don't have any vision, so they will go and wrap around a little bit, try to capitalize, try to take off Lina first, and I think they will be successful. Let's not. All right. यहाँ पे silence तो हुई है लीना, but still. That's the BKB for you. Yes, that is the BKB. No fear at all. जी हाँ, वापस से Remnant back करके चले गए. Would want to get himself to a better position. Fight यहाँ पे शुरुआत ज़रूर हुआ था, but nothing to say कि HP. It's not gonna help them, and PSG.LGD no intentions of extending. Does have that Remnant over here though, and XXS will not want to give away this Roshan. They want to heavily contest around, क्योंकि the only way I see Aster coming back is trying to get something positive out in this Roshan They're going for fight. Lina. Yeah. Very smart choice. Very good one at that. And देखिए ये silence के बाद तो नहीं बच रहे. And split arrows का भी इस्तेमाल, और इस समय मोने trying to dish out as much damage as possible, but देखिए यहाँ पे काफी करीब आ गए थे. Disruption का इस्तेमाल हो गया है मोने के ऊपर. Nothing to say का एक ही objective रहने वाला है. Familiar भी आगे बढ़ा रहे हैं. There comes that stun curve, and मोने, he is absolutely helpless in this situation. आमे भी इस fight के हिस्सेदार, जितना damage हो सके deal कर रहे हैं, और Aster के 4 players ध्वस्त इस समय, और इसका मतलब तो साफ है विशाल. Very smart play again. They went on to Lina. जबकि इतने सारे हीरो सामने थे, they went for the hero that was standing at the end. Lina को मारा, and they again went on to Draw Ranger because these are the only two heroes that can dish out damage. As of now, Pangolier से stun करने वाला है. So see, they went for Lina. इतने सारे heroes है. Kills them with Static Storm. Pango का ulti खत्म हो गया, and now they go on to the Draw Ranger. While Visage tries to kill Pango. I think one-sided सा जा रहा है ये गेम थोड़ा. हाँ, one-sided सा जा रहा है. जो हमने anticipate किया था कि शायद late game तक जाता, वो मुझे नहीं नजर आ रहे हैं उसके chances. And it's all begun from the starting. जी. I didn't see a single moment जहाँ पे Aster was gaining anything out of any fight. 17-5. Moonlight Shadow from Aster. Yep. They might go and try to get one pick off, but who? Which is the highest net worth hero that they can kill? Put everything on him. Ricky? It's Ricky, but killing Ricky is very tough with the amount of stuns that they have. And he has AGS, by the way. So makes no sense. Ricky farm karega bhi, and same will be expected out of Dro and Lina. As of now, because they did not snowball, the effectiveness of Draw Ranger goes down a lot. And Lina. जो early stage का impact था अभी जाके feel होगा Aster को.
falling a little far behind in this game. Top lane पे काफी ज़्यादा pressure build up किया जा रहा है by PSG.LGD as they go for a push on this tier 2 tower और ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसको take down करने के लिए. Quite easy for them. But नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे Aster को respect देते हुए wrap around करने की कोशिश करेंगे. Nothing to say. Aster के players पेड़ों में छुपे हुए हैं. But छुपने की कोई भी जगह बाकी नहीं बची है. सीधा dive करते हुए. Just TP. Bango, just TP. Is trying to He's just trying to delay the inevitable. And वहाँ पे अगर searing chains connect कर जाता could have been a different story. But the story cannot be the same anymore. और फिर से यहाँ पे Shadow Demon. Bango trying to block off the creep wave so that वो tier 3 ना चढ़ पाए. But they are going to. PSG is going to back off. Interesting. कि Ember Spirit Desolator बनाने वाले. And this will help them to get towers faster. Less armor to the tower. Smoke up by PSG. They're going to try to find something and then sweep up the bottom lane. And they get draw ranger. Wow. Oh, देखिए ये सांड जैसे चले गए. No, but silence. You see, no damage from draw. अरे लग गए. Lina has a BKB. Yeah, see, the armor is so high that कुछ नहीं होगा. BKB no stuns. पर ulti तो है, but Ricky goes on to Saturday and kills him off. Then no mana with जी हाँ. तो यहाँ पे इस moment पे wow, sort of a respite a little bit, at least for Team Aster, gaining a lot of value. Nothing to Seka pick off. बहुत ही ज़्यादा important होने वाला है. Could follow it up with a Y. He's trying to go for an escape as आमे धीरे धीरे वो और ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं. इस समय PSG.LGD के players जहाँ पे लगा था कि ये फाइट थोड़ा सा हाथों से निकल सकता है. Lost out on Ember, one of their important cores. But a trade-off where you get both Lina, in fact three of the main cores, Bango, Dro and Lina. I think PSG.LGD का अभी भी इस मैच के अंदर काफ़ी अच्छा बोलबाला है. अभी भी मोमेंटम काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं. जैसा आपने बोला बोलबाला तो है. इनफैक्ट इतना तेज़ है कि एस्टर के कान फट रहे हैं. At this time, I look back on the previous team fight that happened bot lane पे. Again, result, I mean, कुछ अलग नहीं हो रहा है. It's PSG and Aster fighting and Aster losing every single time. Yeah, I think this was the only time where they managed to deal with the Ember. और फिर से static storm into kinetic field. फिर से silence हो चुके हैं Dro. He desperately needs to get that BKB, have a little bit more sustainability in this fight. I mean, अब जिस point पे आ चुके, I think does have that chicken pike. So Ember is now at 7-second BKB charge in the next fight. So he's used it 3 times now. It will be interesting to see what pans out in the next 6-7 minutes. आरो क्या यहाँ पे comeback की उम्मीद की जा सकती है Aster से? हाँ बिल्कुल. I mean you cannot say कि Aster अभी बाहर है. Because the fight जो अभी हुई, it was a good fight provided that Bango काफ़ी late आए थे fight में, and if you saw that then he was the guy जो पूरा fight control कर रहे थे. Imagine him controlling the fight plus Lina and Dro hitting at the same time. So that needs to happen. It is very important. But this Heaven's Halberd on Zinkyu, ये तो कुछ अलग ही कहानी सुनाएगा because एक और बड़ा आइटम Assault Cuirass भी आ चुका है. So Deso on Ember, Visage पे Assault Cuirass means यहाँ पे Aster के जो heroes हैं, at least Shadow Demon तो paper है ही हैं. Lina अगर भी right click DPS में फंस जाती हैं, she's also gonna fall down. I mean tankability इस समय Aster के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत बन चुकी है. What do they do, Vishal? Next is what? Next is Moonlight Shadow and try to fight again. Catch one hero surprisingly, which I believe is going to be a backline hero, so that reveal हो गया वो का. Just pops out by LGD, finds no one. That's a good arrow, and no, they cannot bust her. Oh wow! Maybe. They did. Yes. Beautiful.
and Primal Beast is probably dead as well. Silence from her. तो दो free This is a kills free का tower था, for them. This is a free mid tower for them. If they go for it right now, they have to get the tower gold. I think Draw को disrupt करेंगे and easy tower. Yeah, if they can successfully do that, but I think counter initiation का इंतजार है, जहाँ पे ओरी थोड़े से backlines पे है, just waiting for somebody to try and pick fight on XXS. जैसे आपने कहा, easy mid tower मिल चुका है, तो थोड़ी सी राहत की सांस यहाँ पे आता हुआ एस्टर के प्लेयर्स को, because उस फाइट के अंदर मोने भी थे, वहाँ पे ओरी भी थे, तो अब ओरी को थोड़ा सब्सटैंशियल फार्म रिकवर ज़रूर हुआ है, एंड अब थोड़ा सा स्टॉलिंग गेम के तरफ जाना पड़ेगा, जो नेक्स्ट एक और आई थिंक स्मोक गैंग लेना पड़ेगा बिफोर दे कैन हेड ऑन फॉर दैट रोश फाइट. Yes. So PSG would definitely go to dire jungle now, because PSG Aster would try to regain their jungle control. Grouping up. They don't have Moonlight Shadow, so it will be difficult. Oh wow, next item is Blink for Ember. Roshan would be back soon as well. Mindbreaker for Ricky, wow. A gift from the tempest of battle. अभी तो मेरे को ये देखना है कि मिड पे पूरी की पूरी एस्टर की टीम ग्रुप हुई थी और अब बॉट साइड जंगल में जा चुके हैं अपने डायर साइड के. ऑन द अदर साइड PSG.LGD टॉप साइड पे घूमती हुई हमें नजर आ रही है. तो दोनों की दोनों टीम्स रोशान के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, वेयर PSG वांट्स टू गो फॉर इट. एस्टर काउंटर एंगेज करके टीम फाइट फोर्स करेगी आई बिलीव. आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट जैसे विशाल ने कहा था, They wait for Rosh. या सो जस्ट बैंकिंग अराउंड रोश, मेकिंग श्योर उनके पास वो डायर का टॉप जंगल का कंट्रोल तो एटलीस्ट रहेगा. उन्होंने वार्ड्स भी वहाँ पे प्लेस कर रखे हैं, सो एनी unwarranted movements यहाँ पे PSG.LGD will sense it out, but Zinky a little out of position, instantly यहाँ पे burst out कर देंगे. What a burst! And this is a beautiful fight that has begun. और इस समय यहाँ पे Aster के players finally regaining some balance और Rosh is up. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि विशाल इसके बारे में आपने पहले भी चर्चा कर रखा था कि एस्टर की जो रॉश फाइट पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा डेडली है. एंड इस समय तो PSG.LGD विदाउट द प्राइमल आई डोंट थिंक दे वुड वांट टू इवन थिंक अबाउट इट. सो प्राइमल बीस्ट जो PSG.LGD का सबसे टैंकी हीरो है, यू सॉ व्हाट हैपेंड टू हिम राइट. इमेजिन दैट इन द रॉश. दैट्स व्हाट आई मेंट. So yes, there is definitely a very high chance कि Rosh fight might turn the game around, but it's all about control right now and letting Draw farm separately. But Aster अपना काफ़ी टाइम एक साथ बिता रही है, तो Draw is not able to gain that kind of farm. If you see, Lina is farming separately. That's why net worth change है काफ़ी. चलिए फिर से fight without Lina. Moonlight Shadow goes up. Good disruption, but I don't think so they will be able to do it. Nah, not happening anymore. XXS और ऑलरेडी Shadow Demon हो चुके इस गेम से बाहर. लगभग मैच 30 सेकंड के लिए नहीं रहने वाले दो प्लेयर्स एस्टर के, और आगाज़ हो सकता है कि यहाँ पे रॉश पिट के अंदर जाए, बट जस्ट बिफोर दैट गेटिंग दोज इम्पॉर्टेंट डी-वॉर्ड्स, टेकिंग दैट विजन जो एस्टर ने थोड़ी देर पहले ही PSG.LGD को डिनाई किया था, वापस से उन्होंने अपना खुद का विजन सेटअप कर दिया. सो विजन का जो ये गेम चल रहा है उसी के बीचों बीच यहाँ पे रोशान बहुत ही जल्द इस बार मेल्ट हो चुका है. फिर से आमे कंट्रोल लेते हुए. I like the way जैसे उन्होंने फाइट करी. It was Ember first जिनका हिट पहले लगा, and then Ricky jumped on him so that he has the advantage of minus armor. Desok के साइड से. So beautiful execution again. They know what they are doing. And this is going to be a tower probably. There's no way that Aster can defend this. They have to split push. क्योंकि अगर फाइट करके मार भी देते हैं. Good one. चलिए बीके भी लगा चुके हैं. मोने को फाइनली अपना एक इम्पोर्टेंट आइटम भी आ गया है. There you go. ओरी गेटिंग टेकन डाउन. लगूना ब्लेड का इस्तेमाल ज़रूर किया था, बट साथ ही साथ फाइनली वी कैन सी फ्यू ऑफ देयर कोर्स फॉलिंग डाउन. आमे का एजिस वापस से पॉप ज़रूर होगा. एस्टर यहाँ पे प्रिपेयर्ड, बट आमे ने अपना बीके भी खोल के जलवा दिखा दिया है, और इसी के साथ एक और पिक निकालते हुए
3 प्लेयर्स यहाँ पे एस्टर के बाहर हो चुके हैं एंड आमे ही इज ऑन अ गॉड लाइक स्प्री। अब इस समय ज़रूर पैंगो ने जेम पकड़ रखा है, सो यू नो डेस्परेट टाइम्स इस समय दे नो कि दे हैव टू गेट सम विजन कंट्रोल बैक, दे हैव टू स्पॉट आउट द रिकी, क्योंकि एक पॉइंट पे इवन इफ रिकी का अगर बीके भी खत्म हो जाता है, इफ समहाउ और द अदर ही गेट्स कॉट इन दैट डिसरप्शन एंड द फॉलो अप्स आर जस्ट टू मच। लीना भी मौजूद है यहाँ पे, ड्राउ भी मौजूद है, साइलेंस भी कर देंगे, अभी भी यू नो डैमेज पोटेंशियल को बिल्कुल भी खारिज नहीं कर सकते टीम एस्टर का। They get a good fight, they take a good position, they are absolutely gonna roll. And for that to happen, XXS, he literally has to roll and create that chaos in those team fights. But I think छोटी-छोटी खुशियाँ यहाँ पे enjoy कर रही है टीम एस्टर, but अभी भी कहूँगा दिल्ली काफ़ी दूर है। Yes, ड्रो रेंजर जो अपने आप को पोजीशन कर रहे थे इस फाइट में, it was outstanding I would say because he was hitting it from the woods. And उनकी end तक full HP थी, so they were not able to focus on her. Beautiful execution by Dro. I wish that Lina भी अगर जिंदा होती तो it would have been a different story. And the amount of efforts that Pango is putting to lock down these heroes when they are not in their BKBs is exponentially very well. So yes, don't count Aster out yet because Lina and Dro are getting to a point that they might become a problem soon. And yeah. BKBs are going down from PSG.LGD side as well. And this is where एक 5-man smoke इस बार एजिस you know के सहारे के बिना चलने वाले हैं। यहाँ पे एक और सेंट्री डिवॉर्ड की गई है। And there you go, they've been spotted out. बोबोका यहाँ पे फंस जाने वाले। It is going to be XXS in the meanwhile. There you have it, Mirana being taken out, static storm into kinetic field यहाँ पे खुल चुका है, but मोने पीछे बैकलाइन से डैमेज देने का पूरा प्रयास, हरिकेन पाइक का भी इस्तेमाल किया, आमे को थोड़ा दूर रखा और इसी के सहारे प्राइमल बीस्ट हैज फॉलन। जिंक्यू को कोई चैन शांति नहीं, बट एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस तरीके से XXS वहाँ पे पकड़े गए थे, has managed to keep himself alive. That's a good thing at this moment, a 1-for-1 trade. But considering the fact कि the primal beast was certainly doing better than Mirana, थोड़ा बहुत gold जो है यहाँ पे एस्टर के पास आ रहा है, and their course I would take this trade any day. Yes. PSG wasted a smoke. They got a core, not a core, but an important hero to die, and in return they only get Mirana, who eventually used everything already. And beautiful positioning again, like I said, from Dro. Dro hit ही नहीं कर रही है जब तक she is into a place where she's comfortable कि वहाँ से मैं hit करूँगी. So very nice play. I think at this point, Ame is looking at getting his Skadi, जो कि अभी आ भी चुका है, तो और ज़्यादा टैंकेबिलिटी, थोड़ा बहुत स्लो आ रहा है। आर्मर यहाँ पे तो ऑलरेडी अव्वल चल रहे हैं PSG.LGD। उस मामले में हमने देखा कितना जल्दी उन्होंने रोश को मेल्ट डाउन करा, दैट AC, दैट डेसोलेटर, एंड देन यू हैव रिकीज बैकस्टैब डैमेज आल्सो एडिंग ऑन, एंड फिर से एक और स्मोक, एंड इस बार देखते हैं, दिस इज द लास्ट स्मोक प्रोबब्ली। जी हाँ, इस बार देखना यही रहेगा कि क्या यहाँ पे इस फाइट से कुछ निकाल सकते हैं किसी प्लेयर को। अगर दे नीड अ लीना और फिर से बोबोका पकड़े ही ब्रेक हो चुका है। जी हाँ, XSS ने इसकी ऑलरेडी शुरुआत कर ली है, रोलिंग थंडर का प्रयास। मोने थोड़े से बैकलाइंस पे यहाँ पे फोकस डाउन करने की कोशिश, नथिंग टू से के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डैमेज ज़रूर दिया, हरिकेन पाइक करके थोड़ा सा साइड में आ चुके हैं, बट इन द सेम टाइम यहाँ पे लीना भी अपना जलवा दिखाती हुई, प्राइमल बीस्ट तो जिंदा नहीं रह रहे हैं। इसी के साथ नथिंग टू से अभी के लिए फाइट के अंदर रीइंगेज तो नहीं करेंगे, एक जोन आउट स्टैटिक स्टॉर्म इनटू काइनेटिक फील्ड, और यहाँ पे PSG.LGD धीरे धीरे करके, दिस इज द बॉटम टावर फॉर एस्टर। जी हाँ, और एक पॉइंट पे विशाल अगर आप देखें नेटवर्थ के तरफ अगर नज़र डालें, वो 5-6 हज़ार के ऊपर चला गया था, अब महज 2,000 ही बचे हैं, और हमें भी पता है वंस लीना एंड ड्रो एंड दिस कॉम्बो गेट्स एग्जीक्यूटेड, आई रियली फील दैट XXS इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब ऑन दिस Pangoliers इनिशिएटिंग ऑल दोस फाइट्स। वाओ, लुक एट दैट Mirana, look at that damage. The damage output पता भी नहीं चला, नथिंग टू से कब गायब हो गए, बट इस समय यहाँ पे PSG.LGD को किसी भी हाल में विसाज को जिंदा रखना पड़ेगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। फेथ बियॉन्ड पूरी जद्दोजहद कोशिश, एंड दिस इज पोटेंशियली हाई ग्राउंड
for Aster. जरूर फोर्स आउट तो करवाना चाहेंगे. मैं देखना चाहता हूँ कुछ बायबैक स्टेटस है भी या नहीं यहाँ पे टीम PSG.LGD के पास, क्योंकि जिस गति से ये टावर्स गिर रहे हैं जैसे आपने कहा, बट ओरी के पास माना की थोड़ी सी. So Visage has a buyback, Ember doesn't have. Oh, now this is going to hurt. क्योंकि नथिंग टू से का यहाँ पे ना रहना और यहाँ पे फाइनल जो लाइन ऑफ डिफेंस है, ग्लिफ ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑन कर दिया गया है. इसी के साथ स्वॉशबकल भी मार रहे हैं और ये टावर तो यहाँ पे मक्खन की तरह मेल्ट करता हुआ, और इसी के साथ रैक्स भी जा रहा है. जहाँ पे PSG.LGD की इतनी अच्छी शुरुआत हुई थी, कहीं ना कहीं संयम दिखाया एस्टर के प्लेयर्स ने. पिक ऑफ्स जो गैंग्स करने के प्रयास थे और ये जो विजन कंट्रोल मैं बोलूँगा एस्टर के पास था. With that gem getting trying to get all the D-wards. अब ये जंगल PSG का नहीं है, ये एस्टर का जंगल है. जो सिचुएशन बेसिकली एस्टर की हुई थी पहले 15 मिनट के अंदर, अब एस्टर ने वो हालत PSG की करके रख दी है. एंड आई थिंक फ्रॉम हियर ऑन आउट गेम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएगा, बिकॉज अगर एक भी टीम फाइट गलत जाती है PSG को मुंह की खानी पड़ेगी, बिकॉज एस्टर ने एक चीज एक्स्ट्रा करी है, दैट इज दे हैव डिस्ट्रॉयड द बॉट लेन बैरिक्स. जी हाँ. एंड नाउ आई थिंक देखिए गोल्ड एडवांटेज भी 5000 अब एस्टर के खेमे में आ चुका है, और यहाँ से आई थिंक दे आर जस्ट गोना स्केल अबव अनलेस एंड अनटिल दे फोर्स मेनी मिस्टेक्स. बट एस्टर अभी तक मेन स्टेजेस में हमने जितने भी गेम्स देखे, बहुत एनी रेयर ओकेजन्स रहे हैं जहाँ पे गेम्स को इन्होंने अपने चंगुलों से फिसलने दिया है. जी. सो I don't think that's going to happen, but what is the saving grace for PSG.LGD इस समय विशाल? Yeah, it's a mistake from Aster, basically not positioning their Lina or Draw properly. If अगर PSG को ऐसा लगता है कि Lina और Draw is not in a right position, they have to go all in and burst down Lina or Draw, one of them. Because अगर Draw जिंदा है तो Lina भी dish out करेगी हाथ physical damage काफी, because aura is there for all the ranged heroes. And Disruptor always needs to go on Shadow Demon because वो काफी बचा रहा है लोगों को. 5-man smoke ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है, बट ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ही गंदे पोजीशन पे पकड़े जा चुके हैं बोबो का. उनको रिट्रीट करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले रहे हैं स्टैटिक स्टॉर्म के अंदर, एंड ग्लिम्स का भी इस्तेमाल कर दिया गया. इन द मीनवाइल XXS अपना रोलिंग थंडर के सहारे जस्ट ट्राइंग टू कीप द एनिमी एट बे. That's a fast Roshan by the way as well. जी हाँ, रोशान भी काफ़ी जल्दी स्पॉन हो चुका है. अब पूरा गेम तो रोशान का ही होगा. अब ये जो मैच के अंदर हमने गतिविधि देखी है दोनों टीम्स की, PSG.LGD इतनी मशहूर नहीं है इस पॉइंट पे इतना अच्छा लीड देके वापस गेम एस्टर के हाथ सौंपाने. You know what is the interesting part? कि PSG.LGD is also good in Rosh fight. If they find Aster in the pit. अगर, क्योंकि they do have those items also, they do have the damage at this moment, but Ember has started to fall off a little bit. Ember बहुत ही weird positions पे caught out हो रहे हैं, and even the silence coming out और जो damage burst मिल रहा है, the right click potential itself is hurting him. And इस point पे he's got a Aster Daedalus. smoked up again, but they have to go high ground, so it is still going to be bad for them. Rolling Thunder, he catches Ricky, and what a beautiful static storm. स्टार्टिंग स्टॉर्म तो बहुत ही बेहतरीन था, बट बीके भी चला दिया है. तो मेन जो कोर्स है उनको तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इस समय फेथ बियान ही इज ऑन अ रिट्रीट, एंड दिस इज प्रीटी मच इट. अभी रिकी टू मिराना ट्रेड. जी हाँ, रिकी टू मिराना ट्रेड, और इसका मतलब है थैंक यू सो मच फॉर दिस रोशान, क्योंकि अब once Mone also gets in XSS. No static storm as well. Yes. I think thank you so much for the game हो सकता है, क्योंकि ये रोशान जैसे हमने ऑलरेडी एंटिसिपेट किया था बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है गेम्स का. And that is a free refresher as well. Free refresher for Pango. So 2 बार यहाँ पे घूमेंगे. तो मिड लेन पे वेव है, उसको एस्कॉर्ट करके ले जा सकते हैं. टियर 2 टियर 3 बैरक्स अगर ब्रेक हो गए तो गेम कहीं ना कहीं एस्टर की 90% सिक्योर हो जाएगी. So they will opt out to go for top more than mid, because mid is very defensible dire side with the lineup. और so they are moving towards top, gets the first tower.
But PSG also gets a free fortification because of the first tower was taken right now. Alright, चलो. Aster chill करते हुए थोड़ा and यहाँ पे now Dro is going to hit like a truck. जी हाँ. Look at Lina. ट्रक एक तरफ, बुलडोजर भी उनके बगल में, और यहाँ पे PSG.LGD वो इमारत की तरह है जो अभी डिमोलिश होने वाली है. और So now you just इसके illusions निकालो, मांटा तो है ही, and let her break the tower. You don't go. बहुत ही स्मार्ट प्ले यहाँ पे. Moonlight Shadows goes off and Rolling Thunder के साथ अंदर घुसते हुए Primal Beast का charge disrupt करते हुए, and there goes your Ember. No buyback. Oh, this is disgusting. यहाँ पे पूरा फाइट का कंट्रोल ले चुके हैं. किसी भी प्लेयर HP देखिए एस्टर का कम नहीं हुआ है. और this is pretty much GGWP. और I think फेथ बियान वापस से बेस के अंदर जाना चाहेंगे, बट रिफ्रेशर शॉट का I think इस्तेमाल किया गया था वहाँ पे पैंगो के द्वारा. और there you go, the GG being called out. PSG.LGD ने शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी, बट अंतिम जो रेस लाइन को क्रॉस किया है यहाँ पे है वो है टीम एस्टर. इंतज़ार किया छोटे छोटे चीज़ों का, विजन लिया, कंट्रोल लिया गेम का पूरा, और इसी के साथ A special mention is Pango for controlling the fight, and second special mention to the Draw Ranger for positioning herself beautifully and making sure she hits enough कि वो damage dish out जो करना है वो कर पाए. So yes, what a play by Aster. And ये सीरीज के अंदर 1-0 की लीड फिर से खदेड़ दिया PSG.LGD को उस मुकाम पर जहाँ पे करो या मरो वाली परिस्थिति में दूसरी बार आ गए. एक सेकंड, अब नाउ अ क्वेश्चन. आपने ड्रो रेंजर पैंगोलियर की तो तारीफ कर दी, बट व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर PSG? क्या गलत किया? They were not able to catch Lina or a Dro at the right times because Dro was so good at positioning herself. What they did at the early game was so smart. Basically, do not let them stack and do not let Lina farm the camps and do not let Dro Ranger to farm the camps. They did that very right. Possibly the best solution for them would have been ki they could have taken the jungle control of Dire and capitalized from the top lane and possibly got onto the tier 3 at like 20 minutes or something. That would have changed everything. After that they also got a Roshan, so after Roshan they could have gone for the mid tier 2, and with that the game would have been PSG's. But again they need to catch up the Draw Ranger and the Lina to be able to win any fights. ये होती है प्रोफेशनल नॉलेज. सुनिए तो फिर मैं भी बोल रहा हूँ अपना प्रोफेशनल नॉलेज देता हूँ. देखिए सुनो फिर क्या हुआ, गेम चेंज कब हुआ मुझे लगता है जब वो अरे सुनिए तो look at this fight. Look at Draw. यहाँ पे पोजीशनिंग देखिए किस तरीके से अपने आप को पहले पीछे लेते हैं, टावर के नीचे आते हैं और फिर उसके बाद साइलेंस करके मारते हैं. There goes Ricky, but जो नेक्स्ट वाली फाइट है आई थिंक दिस वाज नॉट द वन. हाँ इसके बाद वाली जो फाइट है ये तो अर्ली गेम पे डोमिनेशन चल रहा था. 25 मिनट के बाद एस्टर चालू हुई. देखिए लुक एट दिस वन. हाँ इस मोमेंट पे आई गेस इससे पहले जो डायर का पैंगो इतना ज्यादा केओस क्रिएट कर रहे हैं इस सबके बीच में कि कितना रूम मिल रहा है. मोने इज गोइंग अनकंटेस्टेड, उनके ऊपर कोई चढ़ ही नहीं पा रहा है. ऐसा लग रहा है किसी का विजन ही नहीं है. ये एजेस लेने के बाद की फाइट है और यहाँ पे इट वाज प्रीटी मच डन एंड डस्टेड. यहाँ से वो शुरुआत हुआ था वो जो कमबैक का, एंड ड्रो वाज एक्सेप्शनली ब्रिलियंट. ये तो फाइनल फेजेस पे आ गए थे, बट यू नो द पॉइंट आई वाज गेटिंग एट जॉनी इज द फैक्ट कि विशाल काफी बातचीत कर रहे थे अबाउट द विजन. मुझे लगा यहाँ पे एक रिस्क लिया था पैंगो ने, वो जेम उठा के वो जेम उठाया, अपना जंगल पहले सिक्योर किया. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स PSG.LGD जब भी डायर जंगल के अंदर घुसी थी दे वर विदाउट विजन, दे वर नॉट गोइंग, दे डिड नॉट नो व्हाट वेयर दे वर हेडिंग एट. एंड इसका फायदा ऑब्वियसली XSS ने उठाया क्योंकि उसके बाद आई डिड नॉट सी द पैंगोलियर फॉलिंग डाउन इवन वंस. ही वाज अलाइव एवरी टाइम. एंड वहाँ पे क्रैट ने माइक लगा लिया है. क्रैट आप कुछ कहना चाहेंगे? क्रैट अपने आप को रोक नहीं पाया. The only reason I didn't cast this match because भाई विशाल the Chinese, first of all चीफ गेस्ट आए थे हमारे, you know, और ही सुपीरियर डोटा के अंदर. हम तीनों का मिला लेंगे तो हम एग्रेसिव 5 पे मैं नेग्लिजिबल हूं, मेरे को कहां इंक्लूड कर रहे हो? मतलब नहीं चलेगा, इसलिए भी आपको डाला ना. या तो मुझे बोलने दो, ये भी मेरी कैटेगरी में ठीक है. तो
मैंने इट्स अ बेटर रिप्लेसमेंट प्लस 2 चाइनीज टीम के मैचेस देखने में बिल्कुल मजा नहीं आता आई न्यू इट एक टाइम पे वी ऑल न्यू इट कि भाई एलजीडी जीतने वाली थी दे वर सो क्लोज दे वर प्लेइंग कॉकी ठीक है नथिंग टू से कि 2-3 ओवर कमिट उसके बाद वो फॉलो ऑफ हो गए इतना तो मुझे भी दिख ही गया था बाद में दे weren't cocky they were dead shot रवीन कुंदू की याद में जो भी है बट एंड ऑफ द डे चाइनीज गेम चाइनीज टीम दे नो हाउ टू हैंडल सिचुएशन एंड आखिरी में लव टू सी दैट लीना एंड मोने दे डिड अ ग्रेट जॉब I think ये I guess दूसरी बार है जब PSG.LGD अपना BO3 का फर्स्ट गेम हारती है। मैंने सुबह ही बोला था इनको आज हार के बाहर हो जाएंगे कहते नहीं होगा सपने देखो बाबा अगर PSG.LGD पहला ही मैच हार जाती है बात अलग है। No guys we need refunds okay we need refunds I'm 101% sure कि तुम्हें भी नहीं पता होगा जो क्या है but हम दोनों को पता है बता ये बता नहीं सकते यहाँ पे everything will be over but it's okay family show oh all right हम भी तो फैमिली हैं कितना अच्छा लग रहा है कि फाइनली 2 सोफे पे 4 लोग बैठे हैं भरा सा लग रहा है परिवार लग रहा है ये साथ में स्क्वाड्रन भी है So the kind of perspective Vishal brings comes from like literally playing competitive Dota India में काफी साल तक. So I think that sort of no, it's actually about I've heard a lot of teams and a lot of players discussing things after the games and before the games, right? So I kind of understand that bit. तो थोड़ा बहुत तो experience है. थोड़ा बहुत नहीं. इंडिया में जितनी भी Dota की टीम्स हैं वो सारी मुंबई के. I always call Mumbai the e-sports capital of India. तो अब इनके यारी में क्राउली हैं, बालाजी हैं, अरे दरिया है हमारे, ठीक है. मतलब ये लोगों के अगर आज उठना बैठना होगा देन आपका अप्रोच ही ऐसा होगा. अब ये चीजें जो जैसे वॉर्ड गेम प्ले इन्होंने बताया कितनी वॉर्ड इंपॉर्टेंस है, द मूवमेंट नो, ये नॉर्मल 3000 MMR वालों को समझ में नहीं आता. टॉकिंग अबाउट द वॉर्ड एंड व्हाट फिक्सेस वाज सेइंग कि पैंगो ने जब जेम उठा लिया था, राइट, सो एज अ टीम यू आर इनटू दैट डिलेमा कि मैं जेम लूं या ना लूं. And it is always better to go ahead and do it because you have a Ricky and you know that तुम्हारा jungle map control जा चुका है. So that there are two things that you can do. One is Ricky, you will be able to spot him very nicely and try to save Drow and Lina from him. Second is you can devour all the wards and all the sentries that PSG has put into the jungle. So yes, that gem pickup was really crucial for the. मुझे लगता है यहाँ पे हमको सिंगापुर जाना चाहिए. आपको तो निकल जाना चाहिए अभी. सेंटोसा आइलैंड घूमेंगे. इनकी फ्लाइट करा दें. करा दीजिए. बेकार की बातें करनी है, वो इतना बढ़िया पॉइंट बोला. अरे उधर जाते आप अलग ही बातें करते हैं. अरे मैं बोल रहा हूँ ये जो एक्सपीरियंस इन्होंने लिया है हमें भी सेम चीज करनी चाहिए. हमें भी प्लेयर्स के साथ जाना चाहिए, बैठना चाहिए. इनके पास भी कुछ होगा तभी इनको एक्सपीरियंस मिल रहा था. आप 4 बंदों के साथ खड़े होकर देखो ऐसी बातें करके दिखाओ. नहीं, क्योंकि if you go ahead with the sentry wards, it's a very big RNG कि बॉस इधर मिलेगा या नहीं मिलेगा, right? इधर वार्ड होगा नहीं होगा, इधर रिक्की होगा नहीं होगा, and there are limited number of sentries as well in the game. So always a gem. Then again 2 चाइनीज टीम्स हैं, एक दूसरे के साथ साल भर स्क्रिम्स करते हुए आ रहे हैं, तो काफी सारे VODs तो देखे ही होंगे कब कौन से जगह प्रेफर करते हैं. सबके थोड़े अलग स्पॉट्स होते हैं. इतनी कास्टिंग कर लिया ना. No, so if you remember I said you कि उसने ऊपर वार्ड लगाया है. It was not on the cliff but near the stairs corner पे. उन्होंने सेंट्री डाली थी क्लिफ पर, but they were not able to spot PSG's ward, and eventually with that's the map control that PSG had over Aster. Extra info आ रहा है ना. You have info, you know that part of the map is clear. So दूसरी जगह पे होंगे. हमें विशाल को कल का मैथ्यू का गेम प्ले दिखाना चाहिए. मे बी ये बता पाए कि क्या चल रहा था. मतलब maybe I don't know. देखिए there was a guy in Thunder Awaken, वो उनको पता चल गया था वो हार गए, and he literally spent 15 minutes near the tier 3 premises. अपनी opponent team वो रेडिएंट है डायर वाले जगह पे घूम रहे हैं, and what he is doing is just sniping the couriers. और वो भी ऐसा नहीं कि हर कोरियर को मार रहा है, 5 में से 1 कोरियर बस जिसमें आइटम जा रही है. मतलब इतनी तेज कैसे देख सकता है वो कि आइटम जा रही है फटफट. मतलब वो क्या ही कर रहा था. नहीं नेक्स्ट असैसिन वेंडेटा मार के कोरियर मार रहा है यार. ओके यही दैट्स टीम गोल्ड, राइट? सो कुछ नहीं कर रहा उससे अच्छा तो. अरे देखिए आइटम कितने देर तक डिनाई कर रहा है. बड़ा आइटम मंगाया था माइंड ब्रेकर, ठीक है, जो कोरियर था. अरे वो और उसमें ये भी तो थे पॉइंट. हाँ बीकेबी भाई बीकेबी छीन लिया. तो वैसे मर रहा था 10 बार मर चुका है गेम के अंदर. 10 मिनट में 10 बार मर चुका है. वो निक्स असैसिन करेगा क्या? So there would have been a thinking, right, कि इसमें कुछ बड़ा हो सकता है. हाँ. So it's a chance that he took कि कुछ बड़ा मिल जाए तो अच्छी बात है, मैं तोड़ दूंगा. For example Divino,
नहीं था इतना लेट नहीं गया था हाँ बट ही वुडंट नो कि उसमें क्या है बट डिनाइंग दैट आइटम गेटिंग टू द राइट पर्सन बीकेबी बन जाएगा राइट तो See, Baba, ऐसा होना कि did they win? No, they lost. Badly, they lost badly. अभी जितना था ही हाँ, नहीं. because वो farm करेगा, he will stop carries farm, carry का XP लेगा. अरे ऐसा होना कि कोरियन मार के टीम के साथ मिलने जाए नहीं कोरियन मार के वही घूम रहा है जंगलों में यार लिटरली 15 मिनट निकाला है और जब टीपी कर रहा था ना तो जॉनी यूज्ड टू पिक दिस रिगुन फिर से निकल गया मिशन पे देखो टॉप से जा रहा है वो करते हुए तो उसने 4 से 5 बार ही जस्ट वेंट देयर और 5-5 मिनट ऐसे मस्त चिलिंग करिए खड़े हो जाते थे बीच में एंशिएंट के उधर घूम रहा है डायरेक्ट एंशिएंट के उधर वहां पे कोरियन जा रहे हैं उनको देख रहा है नहीं मार रहा है उनको भाई He was like कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा हूं हां मैं ऐसा लगा ये भी हमारा पॉइंट है कि लड़ाई होगी मैं टायर हुआ वो भाई भूटानी रेज कर गए थे जब क्रैट के साथ खेलते हैं So he was eventually Bhutani rage level 3 अगर चले कि मेरे वजह से कोई रेज नहीं करता इट्स ऑलवेज द वो आप मानते नहीं हो एक्स्ट्रा स्किल्स भूटानी जी के तभी सब लोग रेस करते हैं नहीं ये आप मानते अभी हाल ही में उन्होंने चेन खेलना चालू किया जस्ट बिकॉज़ केबल क्रॉल में था ठीक है वो डर गए सुनते ही विशाली लाइक क्या हो रहा है झूठ नहीं बोलूंगा जो हमारे साथ दोस्त लोग खेलते हैं जब उसे उठाया तो लोग गालियां दे रहे थे लॉबी में कि क्या कर रहा है यार इतना तो ईमान मत बेच अपना तुझे सीधा हीरो नहीं लगता तू चेन खेलेगा आर्क वार्डन मीपो मतलब आई रिमेंबर फॉर 50 रुपीस पेटीएम उसने मीपो खेल के दिखाया था टू भूटानी मेरे पास क्लिप्स हैं इको स्लैम मतलब इको स्लैम चल गया फिर ब्लिंक आ रहा है मेरे को याद है जब मैं आया था इस सीन के अंदर ई-स्पोर्ट्स सीन के अंदर तब मेरे को डोटा सिखाने की कोशिश करते हमारे एक और मित्र होते थे मिस्टर मनोज गोला ने और उन्होंने मेरे को एडवाइस किया था कि व्हाट डू यू लाइक टू प्ले मैं दूसरी मोवा खेलता था तो उसमें मेरे को पसंद था एक ऐसा कैरेक्टर जिसको पूरी कम्युनिटी हेट करती थी तो उन्होंने बोला यहाँ पे टेकीज खेलो ओके दैट टाइम Yes. वो एक जमाना था आई थिंक बहुत ज्यादा कौन सा टीआई था 2000 मेरे ख्याल से जेरैक्स का था जब 2018-19 के अंदर उन्होंने 19 में आया था ये आई रिमेंबर दैट अल्ट्रा किल निकाली थी टॉप टियर 1 टावर के उधर जेरैक्स ने सुसाइड एंड नो नाइस फॉर आई रिमेंबर व्हाट्स मोस्ट नोटोरियस राइट नाउ हीरो और hero you talking about the kill Notorious I guess. So it's all जो बोलते हैं ना कि डर का खेल होता है जोनी so it's more of like that यहाँ पर it was expected कि primal beast का डर हो जब वो अंदर आए तो he will catch a Lina or a draw वो नहीं था but if you look at the other side जब Pango अंदर जा रहा था डर तो था and their BKBs were down to 5 seconds it was too early BKB for Ember but उसे बनाना भी था वो right so there's nothing he can do as well बट चलिए स्टेज पे प्लेयर्स आने शुरू हो चुके हैं चलते हैं प्लेयर वॉक इन देखते हैं और सुनते हैं कि हमारे इंग्लिश कास्टर्स भी क्या बात कर रहे हैं going into the territory of Aster and doing so that gave them the turnaround. I think if you just tweak that a little bit in mentality and how you want to play, we should probably see the same scenario play out again. Okay, but watching that game, honestly, like I felt that PSG.LGD should have won it, but Aster just played out of their mind. They outplayed them so many times in a row. I wouldn't harp on the draft. I wouldn't harp on like any big strategical mistakes. It was just Aster playing really damn well. Ori on the mid lane, that Lina overperformed. The amount of LSAs that came in clutch, that Mirana arrow that you talked about in the river, it was set up by Ori. He's the one that used the LSA first on the Ember. And a couple of other things that he did. Like he usually feels like the true carry of the team if he's on the Lina. We should bring up the Ricky, though, I think, again, that Arme played, because the early fights that were going well were with Primal Beast, Ember, Disruptor, Visage, kind of, you know, skirmishing around the dire jungle. PSG.LGD were looking great. And then by the time the Ricky came into the fights with Arme, that was really when Aster were putting up their defenses and really well positioning. Would another carry have done something different in the late game? Do you think it's the carry, sorry James, or the itemization perhaps that was early game oriented? Again, yeah, like going back to my earlier point, James, you're so dumb. Don't ever speak again. I really just sheep. They just needed more defensive items, right? Like when now crying, by the way. Oh, good, as you should. I just got so much confidence from winning a game show. I thought I'm going to throw in an opinion. Little did this host opinions allowed. He's only good at drafting. Yes, tell us about it. It's the items. But I like the Ricky, and I like how they worked around the Ricky with like the Desolator on Ember Spirit, knowing that they were fully physical damage. I think everything kind of came together in their cohesion. It was just, when your Visage gets gone on mid, he needs that extra second
second. If you had built a mech on your support instead of these greedier items, then maybe he does survive and you're able to push your advantage. I think that is where they slipped. I was really happy with their draft overall, and I think they played it really well. Yeah, and until then. To go back to James's question, though, at least a little bit, I stole it away. I'll answer it as well. Ricky hasn't been picked, he hasn't been played, and that's for a reason, because you don't necessarily, well, you can't go for those late game items that you usually went for. Like a Battle Fury, Ricky doesn't really feel that great. He even bought a ring and then like, yeah, maybe not, I'll go back to the Diffusal. All right, well, it looks like we're ready for game 2. We will be doing the draft here at the panel. Let's get this on the way. PSG.LGD versus Team Aster. Game 2. PSG.LGD going into the draft. This could be Faith Bian's last game as Aster 1-0 up. Winning this will move them on to finals weekend. And the bans are going to be on the way. A crucial game for PSG.LGD, with Faith Bian being so close to retirement, but yeah, we got Matu coming up next as well, who's probably watching this game. So there's a lot of, I think, fans just really, hoping they just get to see more of some of their favourite players and people who have given Dota so much. But yes, into the picks and bans. I'll let you guys talk it out. Thank you, Tigo, Wizard, and Sheepo. Tell us what it's all about. So looking at the bans real quick, what are the adaptations here? So Aster is first pick, they went for a Sven. They've first faced Sven before, but I don't believe they've actually first picked a Sven at all so far in the tournament. A lot of stuns already coming from the two of them. Very simple. You have a Sven with the stun, you have a Lina with the stun, also very flexible. The Sven can be your position 1 or 5. We have actually seen him today already being played as a carry by the opposing team. Yeah, I guess as well, it could also be you first pick a Sven knowing that Enigma's through the pool, so sure, they're going to go Enigma, but you've already covered yourself with this carry, secures their lane a little bit more, but... Do you think that Silencer needs to be banned out now, Sheepo? Because I have seen Faith Bian play Enigma, and I have seen him get countered and do absolutely nothing. There's a lot of heroes that sort of counter the Enigma that's not Silencer, though, right? If we look at last game, even, the Pango, that's a hero that teams really like to pick. Yeah, you get the Basher, you swashbuckle into the black hole and it can cancel it that way. You have this Sven on Aster already, which they've been playing it as a 5 throughout this event for the most part. Usually it's in response to something, I think. But like a Marcy. But this is coming out the gate without seeing anything. I kind of like it. I think it will help in the lane if they can pick an aggressive carry as well that can help clear the Eidolons in lane. Maybe they don't have to go super hard on countering it. Yeah, I'm not the greatest fan overall of the first pick Sven. Yep. I like it, like you said, as a counter versus the SF, versus the minus armor strats, right? But yeah, it can work. This is such a confident draft though from Aster. They enter it, they do the first pick Sven into Enigma, so they have they're preparing themselves. Then in the second phase, they ban out 3 carries that would pair well into a Sven, but also be a little bit of a nuisance to this mid laner. So they just entered the game going, this is our carry, this is our mid. Not often do you see teams draft like this. They keep it a bit more open. Exactly. Right? And this is where it's like, but these teams have done so many Scream games together, so many tournament games together that they're at like a level above all the other teams when drafting against each other. Aster are considered, like they're winning, they're 1 game up from PSG.LGD, but they are considered the regional slayers in a way that they always perform really great, really well versus their Chinese colleagues, but when they go to the international stage, maybe it's not that great. So if PSG.LGD could choose one team to play against, probably wouldn't be Aster here. But do you think that Sven also might be, like you pick the Sven, then you ban out these heroes that are kind of good against him? Could it be a fake ban maybe? Oh, you're saying 3 fake bans into a pos 5 Sven? 3 fake bans. If they do that, next level. I've not said Giga Chad yet on panel, but they would happily fulfill that role if they were to do that. That'd be a first in draft at least. Do you not think they're just good heroes against Lina more than the Sven? I mean, yeah, it's kind of like a double whammy, but the Lina doesn't like playing against these heroes that outrange her because that's her role, that's her idea. They get the gyro. It's also very flexible. Yeah, I don't know what they're doing. Could be gyro 5, could be gyro carry. That's just fun. Aster draft's just fun. Like they're making sure that they have just laning pairings, right? Let's say it is going to be we've seen gyro support in EU. They have a Sven carry, stun with damage. If you flip it around, same lane, still with damage. So yeah, Aster just being a little bit more creative coming into this game too. I actually think gyro started as a 5 in China as well, like a long time ago, during I think last year's season 1.
We're speedrunning this draft. They could be going back all the way to that, but yeah, TB. I guess this is really nice, right? Because whether Gyro or Sven is your carry on Aster, Terrorblade is just a carry with immense armor and doesn't really care too much about either as well. Like Lina, I would like to see how this game IMIs towards that Ags build that we've seen some people go, like the Ether Lens, Ags, building that magic damage nuke with the shard and stuff as well. It gives PSG just an insurance policy with their playstyle now, where they don't have to be the aggressors running into Aster's defense that they were amazing with in game 1. They can now sit back, push out lanes with Eidolons, go for cheap kills with Tiny Snap. Terrorblade will eventually just outscale the cores that we've seen so far on Aster. So this last pick needs to maybe put a little bit more pressure on that. So it's kind of PSG identifying why they lost game 1. They were the aggressors. Now let's just chill a bit. And this will now be Army playing the Terrorblade. This will now be his 86th Terrorblade game, tied with Artesia at 4th most Terrorblade games. I feel like if you ask any carry, what do you want to win the game alone? Most of them should or would answer TB. Like, this is the ultimate carry, right? Like, you have the illusions to always come back into the game if it goes wrong, and you are the ultimate carry overall. I love the ban from Aster as well. It's like, guys, they're not going to run at us like they did in the previous game. All right, let's ban a Zeus. Let's ban Zeus Puck. Like, these are 2 mid heroes, nothing to say with play. That will just prolong the game and make Aster feel annoyed as each minute progresses. Because this Gyro, I think this Gyro is a carry because the idea is that you max the flak in lane and you deal with the Eidolons in that way. So I'm imagining that he should have a pretty free lane in terms of not being harassed down by these Eidolons. You just make sure that you and your Sven are constantly using your spells on it so that Enigma never has a presence in lane. And then your Gyro just free farms the lane, goes into the jungle, free farms the jungle. I'd like to see some stacks getting built, and then you move him into the triangle. Mirana is a full support that's very easy for her to rotate into that triangle, stack the camp, and then come to the runes and then deal with that. So they have this lineup being very set to give Gyro this strong mid-game timing, so maybe they could outpace the TB in that regard a little bit. So are we looking at some offlane that can actually deal with the Enigma Black Hole? No, they go with the Mars. But yeah, so based off what Sheep said, just double check, Peach, you had played the Sven 5 before, and because you have the Lina mid, it does allow your carry to be more like of a semi-carry, like mixed damage style, because the Lina should be your insurance policy. It's something that we saw in that last game as well. Drow perhaps was the ultimate carry there, but Lina did just as much work. And usually in Chinese region, Lina is the one that ends up carrying the game. All right, James, what's the last hero? I have no idea. All right. So it could be, I'd say, you're looking for a mid. Storm Spirit could be pretty good here, just because you eventually have the wave skipping if the game gets harder. James, what mid do you think would be good? Yeah. That begins with S. You think Silencer's going to get what? No, that's not. We're giving room to steal T's point. I wanted to throw my prediction quickly. Yeah, Silencer's always good. You're right, Sheepo. Thank you. Thank you. Sounds sure, and the Storm, right? Yeah. The Storm. Storm is preferred. Nice idea. Nice idea, man. Thank you, James. Yeah. Yeah, so any sort of a spirit that can play make, because they do have an offlane with a pretty significantly long cooldown in the black hole. Any sort of a spirit to just be able to rotate early on, because you can't really counter the Lina, right? That's one of the reasons why the hero is picked so early on in the game. There is nothing on mid lane that really crushes her. Yeah, one of those heroes that just exists and perfectly scales into either magic damage or physical damage, whatever the game needs. I really liked seeing GPK play Primal Oh no, it's banned. It got banned instantly. I'm sorry, guys. I'm blind. Well, it's also beefy. Yeah, it's something beefy versus Lina. Yeah. I just love how PSG is this team that they go from a game to game, and when they lose, they identify a problem, and the next game it's so clear what their thought process is and why game 1 was wrong. It's a complete identity shift, This right? is a complete shift, and I think that start of change will give PSG a better position to win this game than the previous one. But again, Aster, if they can play like above and beyond like they did in game 1, then one thing that I really like about PSG.LGD's lineup is that even though they picked Enigma very early on, the black hole later on is uncontested. So if you do get to the super late game, it's not only about the TB, it's about Fate Beyond. I just want to see Aster make an effort to invade the jungle where Enigma is. Like from the offlane, usually he takes the tower and then just plays in that area for the next 10 minutes. Just invade it, kill him. Don't let him have a free game. If his late game is uncontested, beat him in the early. All right, and soon we'll be getting away for game number 2. Aster can go into the finals off this one, but PSG.LGD can come back, and someone who's helping that maybe happen
is Xiao8, and we have an interview. Thank you so much. Yes, Slacks here with Jin and Xiao8 yet again. Are you getting bored of seeing me? You guys just keep surviving over and over again? How are you feeling? How are the boys? It's been a long day, a lot of stress. You still got the energy to win this game? 大王就是你可能已经讨厌看到我们俩了，今天已经采访你好几次了，就是是不是看到我们都已经烦了呢？然后包括你们整体的状态怎么样？是否还有能量呢？现在感觉挺好的吧，因为每次好像大家都要一起打最后一把，就是如果再输一把就淘汰了，可能会打得更好吧。We're feeling pretty good because we're kind of used to playing elimination games now at this point, and just having our entire team on the line just makes us play better. Oh, well, that's good to hear. They were very surprised by your draft last time. Now you have a kind of surprising draft, they do at least, with the gyrocopter and other things like that. Were you taken by surprise personally, or were you ready to roll on this one? 上一把你们选了一个比较出乎意料的一个阵容嘛，然后这把他们也算是选了一个比较冷门的一个直升机，然后就想问一下你对这个 BP 有什么看法？就是这个直升机对你来说算是比较意外的吗？我觉得是意料之中，因为现在那个矮人直升飞机用来打谜团这个英雄就比较好用嘛，其实已经想到他们会选这个英雄。It was expected because gyrocopter is considered sort of like a soft counter to Enigma now, so we kind of expected the counter pick in this case. All right, well, it sounds like our game has started, so let's go ahead and throw it on to our casters, my friend. Get ready for game 2. Thank you very much, Sir. Action Slacks, game number 2 between PSG.LGD and Aster, and just in time for us to pause the game. And Synderen, would you like to talk about Ricky a little bit here? Yep. We're 60-minute items. We're 30 seconds before the horn, so any second now. And what do you think of the drafts? Anything surprising? Yeah, so I think the panel kind of hit the nail on the head with LGD making quite a shift, right? So in the last game, I think their lineup was more mid-game momentum-centric with the Ricky carry. In this game, they're taking the approach that, okay, Aster are very good at playing defense. They're good at holding their triangle area. They're good at preventing us from taking full control of the game, even though we have a lead. So this time, we're going to make sure that, well, if their Achilles heel is the early mid game, that they're going to fall behind against us. What if we just have amazing scaling? So instead of a Visage off lane, they now have the Enigma, and now they have a Terrorblade safe lane instead of the Ricky. So a lot stronger late game, I think, is fair to say in terms of the obvious scaling parts of it. But they haven't really compromised very much on their ability to skirmish and teamfight, because they've taken the tiny support, they have a Snapfire 5, so both supports with stuns and teamfight impact, and their mid-hero this time is... Alrighty, ladies and gentlemen, we are back. Aster versus PSG.LGD, जो कि इस वक्त एक गेम डाउन है इस BO3 सीरीज के अंदर. एलिमिनेशन मैच चल रहा है हमारा लोअर ब्रैकेट राउंड 3 का. And well, PSG के ऊपर काफी ज़्यादा प्रेशर रहने वाला है. Aster playing from the Dire side, PSG playing from the Radiant side. इस वक्त अगर Krat यहाँ होते, I know he would just start singing Hi नहीं तेरा कुनका कुनका कुनका, because the man loves कुनका too much. But देखना होगा इस कुनका का impact इस लीना के against mid पे कितना ज़्यादा दिखने वाला है हमको. फिलहाल again, as I always like to say, even trades from either side. XXS को थोड़ा सा संभल के रहना होगा. बॉट लेन में हरास एक्सचेंज तो हुई है, बट XSS seems to be a little too low, और Y इंतजार कर रहे हैं उनको ऑफ पोजीशन में आने का. बट as soon as he overextends, उनके जो सपोर्ट है, he is there to support him quite nicely as well. Y को थोड़ा एक्स्ट्रा डैमेज पड़ता हुआ, little more than necessary. और ये जो रेजर है, it's gonna be important कि ये रेजर जल्दी से फार्म करके ऑनलाइन आए, ताकि PSG is able to deal with Aster's early game pressure. Because Aster फिलहाल अगर नज़र डाली जाए, they are doing quite well in both the bot and the top lane. Waves constantly shove कर रहे हैं, harass कर रहे हैं अपने opposing laners को. Look at this top side. Tiny के ऊपर काफ़ी ज़्यादा damage, dropping him down to 50%. और मुन्ने के gyrocopter, पहला game इस TI के अंदर of him on the gyro. But मुन्ने अपनी टीम के star player है, so we know he's gonna be good on this as well. And in a few moments, the legend shall return again to the desk. Ladies and gentlemen, the next voice you will hear is Vixus. और मेरे आते ही XXS First blood हो गया, आप बहुत ही खराब है. देखिए
अब PSG.LGD गुस्से में आ चुकी है। अगर हम उनके पिछले कुछ रवैये की तरफ नज़र डालें तो हमें भी पता है जॉनी किसके लिए मशहूर है, एंड दैट इज PSG.LGD कमिंग बैक स्ट्रॉन्ग इन गेम नंबर 2। फेथ बियान ने अपना एक्स का जलवा दिखाया ज़रूर था। मुझे लगा था आप लेट गेम बोलेंगे, कंसीडरिंग आपको लेट गेम कितना पसंद है। सुनिए जी, यहाँ पे अगर लेट गेम की तरफ नज़र डालें आप बिल्कुल भी खारिज नहीं कर सकते एस्टर को, क्योंकि जो जायरोकॉप्टर का थर्ड स्किल है ये सबको डैमेज देता है। फ्लैग कैनन एक बार चला दिया आपने, वो टीबी कब चल बसेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बट आमे खेल रहे हैं वो टीबी, और आमे जो प्लेयर हैं आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट कैरीज नॉट जस्ट इन चाइना, इन द एंटायर वर्ल्ड। सो अभी के लिए मैं अगर ड्राफ्ट की तरफ फिर से ध्यान दूं, सॉर्ट ऑफ अ टीम फाइट सेंट्रिक ड्राफ्ट लिया है PSG.LGD। The team fight is pretty much strong, but for Aster it's about those initiations. Mars has to have a really good game. जी। XXS को अपने arenas on point लगवानी पड़ेंगी, have to catch at least 2 or 3 heroes, और प्रायोरिटी यही रहेगा कि जल्द से जल्द एनिग्मा को शट डाउन कर दिया जाए, उनको अपना ब्लैक होल ना चलाया दिया जाए। बट ब्लैक होल इनिशिएशन के लिए भी यहाँ पे देखिए टाइनी है उनके पास। एवलांच अगर कर देते हैं तो एनिग्मा कैन डायरेक्टली गो इन एंड ब्लिंक, बट ही नीड्स अ BKB टू सस्टेन दैट। सो BKB और ब्लिंक बहुत ज़्यादा आवश्यक। वॉम्बो कॉम्बोज की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सुबह ये बात मैं और क्रैक कर रहे थे कि जब भी वॉम्बो कॉम्बोज हमें लगता है आएंगे बहुत ही मज़ेदार से कुछ फ्लैशी प्लेस देखने को मिलेंगे, वो टीम बुरी तरह से हारती है। एंड इस वक्त अगर बात करें टीबी ने काफ़ी ज़्यादा हरास किया था, बट एक कुकी दिया था वाई ने टीबी को, जाइए कूदिए उनके ऊपर मारिए। था ही नहीं मैजिक ट्रिक, इट्स द ग्रेट एस्केप, खुद साक्षात हुडीनी से सीख कर आए थे। बिल्कुल। और इस पॉइंट पे ना जॉनी, अगर लेन्स की तरफ बात करें, ओरी इज हैविंग अ रियली गुड टाइम विद लीना, बट उनका भी कहीं खास दूर नहीं है। मार्स का भी एक अच्छा खासा वक्त चल रहा है सीएसिंग के मामले में, काइंड ऑफ ट्राइंग टू डोमिनेट, क्योंकि अर्ली ऑन टीबी के पास आर्मर बहुत ज़्यादा रहता है। ही इज गॉट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आर्मर्स इन द गेम, बट उनके पास HP उतनी ज़्यादा नहीं। तो अगर आप ऐसे अपना शील्ड ऐसे घुमाते हो, बट फिलहाल के लिए काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुके हैं, और ये यहाँ पे जिंक्यू चाहेंगे कि कुछ उखाड़ पाएँ, बट आप देख सकते हो उनकी जो माना बार है वो लिटरली 0 है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा एंटिसिपेट किया था टीम एस्टर ने, जस्ट प्लेड अराउंड, क्योंकि उधर अगर एवलांच आ जाता तो ऑलमोस्ट लग जाने थे। आई मीन डेफिनेटली, बट सस्टेन था काफ़ी ज़्यादा, तो बच के निकलने में कामयाब रहेंगे। और मिड लेन में जो जद्दोजहद हुई उसका नतीजा ये होता है कि दोनों में से किसी भी टीम को एक भी पिक नहीं मिलेगा। अब ओरी फिर से एक तगड़ा फटका पड़ता हुआ, नथिंग टू से, विद गुड हरास, गुड लेन कंट्रोल, अभी भी काफ़ी अच्छे से सर्वाइव किया कंसिडरिंग जिस तरह से उस फाइट की स्टार्ट हुई थी, वाज एक्सट्रीमली लो। मेरे को तो लगा था कि फिनिश ऑफ हो जाएंगे, बट टॉप लेन में एक और एंगेजमेंट, मोने कुड बी इन ट्रबल, बट क्योंकि अर्ली स्टेज में यहाँ पे उतना डैमेज अवेलेबल नहीं है PSG के पास, मोने विल बी एबल टू सर्वाइव। स्पेन उनका साथ देने की कोशिश तो करते हुए नजर आ रहे हैं, बट ये जो सपोर्ट्स का, इन दोनों सपोर्ट्स का इनफैक्ट जो ट्रेड चल रहा है आपस में, ये ही डिसाइड करने वाला है कि कौन सा कैरी जो है, कौन सा कोर इनफैक्ट बेटर परफॉर्म करेगा इस लेन के अंदर। एंड फिलहाल again a little bit of pressure with the wave being shoved in, cannon भी है थोड़ी देर, और यहीं पे creeps जो हैं खड़े रहने वाले हैं। मोने falls back, पिछली अगली जो इनफैक्ट वेव आ रही है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करने की कोशिश। on the other side dreams against why good trades। जी काफ़ी अच्छी शुरुआत, एटलीस्ट PSG.LGD को फर्स्ट ब्लड मिलता हुआ, और इस समय हम उस यही अर्ली फेज में इसी की बात कर रहा था। देखिए ये जो फ्लैग कैनन आता है ना, चारों तरफ डैमेज डिश आउट करता है, बट मोने हमको पता है काफ़ी कम गलतियां करते हैं, बट अभी के लिए फंस चुके हैं। टॉरेंट आता हुआ उछाल भी दिया है उनको, और ये जो जायरोकॉप्टर का छोटा सा हेलीकॉप्टर था वो हिमालय की पर्वत पे जाके क्रैश करता हुआ
नथिंग टू से ऊपर गए गैंग करने और फिर मारने के बाद नोटिस मी करते हुए नजर आ रहे हैं। करेंगे मोने। आई बिलीव उस लीना को बोलना चाहते हैं कि बता तो देते मैं नहीं हूँ। करेंगे मोने गुस्से में आ गए। मतलब मैंने आई थिंक मोने जैसे कैरीज बहुत कम देखे। पोजिशनिंग A1, गलतियों की जो गुंजाइश है, जो विंडो ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स उनका बहुत कम है। एंड वंस ही गेट्स ऑनलाइन जॉनी, आई मीन जो डिजायर्ड आइटम्स रहते एक बार आ जाता है तो जायरो को रोकना बहुत मुश्किल है। बट देन अगेन यू कैन नेवर डिसरिगार्ड एन आर्मेड टीबी। वो संडर जब तक रहेगा, अगर आप संडर का अच्छा इस्तेमाल कर देंगे तो हारी हुई बाजी भी अपने नाम कर सकते हैं। अरे मोह के सामने डिनाई कर दिया। बारे में फिक्सेस हमारे परिवार वाले क्या कह रहे हैं? हमारे परिवार वाले देखिए हमारे साथ अभी जुड़ने वाले फिर से एरो, और एरो का नाम लिया और वो सेक्रेड एरो भी चला दिया गया है। तो PSG.LGD 2-1 की बढ़त, मोने को अर्ली शटडाउन किया गया है और ये थोड़ा देर सिलसिला चलता रहेगा। बट विशाल, सिंस आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप बताइए ड्राफ्ट को देख के आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा इस गेम के अंदर भारी है? Dire's middle tower is under attack. जी, उनका मिड है। I'm not a fan of Tiny being supported. इस बार हमने काफी टाइनीज, मतलब लिटरली 70% गेम्स में हमने टाइनीज को देखा है। एंड आई थिंक उस 70% में से 80% टाइनीज सपोर्ट पे ही खिला रहे हैं आजकल। एक वो ऐतिहासिक गेम जो आपने भी नोटिस किया होगा, एंटिटी वर्सेस RNG, जहाँ पे टाइनी सपोर्ट से तब्दील हो गए थे कैरी के तरफ और काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट था। बट वेयर डू यू सी दिस गेम गोइंग इन द नेक्स्ट 10 to 15 minutes? In your house, Crat. Mike? अरे आप ऑन हो चुके हैं, you're always turned on. Okay, so एक पैक्ट है मेरा और फिक्सेस का, अगर we both stay bachelor till 40, so me and fixes will be an open relationship. बिल्कुल. And will include one more person as we discussed. And it's legal now. It's legal now, तो हम बातें भी I कर would सकते love हैं. to spend my life with fixes. Fixes is a tantrum guy. साथ रह रहे हो तो ओपन रिलेशनशिप कीजिए। मतलब जो भी है, like 40 के बाद if you're not expecting anything, might as well get married. I want life में fun and fixes is someone जिसके around रह के मैं खुश रह सकता हूँ। Really? Yeah. दिल पे totally. हाथ रख के। 101%. देखिए, So मैं तो नहीं रख सकता। जॉनी आपके और हमारे विचार अलग हैं. Fixes is like कैफीन, छोटे डोसेस में इट्स गुड फॉर, अगर आप चेक करने लगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। बट अभी देखिए टॉप के तरफ आमे, फेदबिया सभी आ चुके हैं। general power trade-off. Yep. But I think that they can TP to defend, maybe or maybe not. But काफी जल्दी 10 मिनट के अंदर ही भाई, मतलब सोचो फेदबियान की लेन के अंदर जाकर अभी जितनी बार भी एनिग्मा पिक ऑफ हुआ है, और इवन हमने पैनल में भी सुना था कि दे नीड टू इनेबल फेदबियान, और एनिग्मा जैसे प्लेयर देखे आई डोंट थिंक कि आप किसी को इनेबल कर रहे हो, यू जस्ट पुटिंग मोर प्रेशर। बिकॉज अगर आप एक प्लेयर को इतना बड़ा स्किल वाला, मतलब हैवी कूल डाउन वाला स्किल दे रहे हो, इट्स नॉट इजी। और यहाँ पे जो लीना है उस पर बोट कॉम्बो लगाने की कोशिश, बट अफसोस दैट अरीना। और देखते स्फीयर किसको मारेंगे यहाँ पर, उन्होंने एफआई को, वाई को तो पिक ऑफ कर लिया, एंड एक और क्लीन एस्टर के बोबो को गॉट अ डबल किल। वाई एंड दोनों पोजीशन 5 and 4 अभी के लिए पवेलियन वापस जा चुके हैं। एंड ओरी दूसरी बार लगातार लीना खेल रहे हैं, एंड व्हाई नॉट इफ दे वांट टू मूव फॉरवर्ड इन लोअर ब्रैकेट। परफेक्ट कॉल। बाय द वे क्रैट, आप नहीं थे यहाँ पे तो मैंने ही खुद से अकेले में ही गाना गा दिया। कौन सा वाला? है नहीं तेरा कौन सा ब्यूटीफुल। ओके, और यहाँ पर और भी कुछ बहुत कुछ यहाँ पे चलता हुआ। पाकिस्तान की काफी सारी विकेट गिर चुकी है, बट नथिंग टू से प्लेइंग कुंका। और मिड टावर भी उन्होंने खो दिया। Yeah, they got it for free. Not really free, but they had to take a fight. Interesting part is Aster is still at Dire side for some reason. जी। They should have switched. So ऐसा हो चुका है, पता है विशाल, ये हो चुका है, पता है, मतलब आई डोंट थिंक कि अब वो लेफ्ट राइट वाला चलता है। नहीं क्रैट, आई थिंक इसके बारे में इंग्लिश पैनलिस्ट ने एक स्टैटिस्टिक्स पुल ऑफ किया था।
जहाँ पे the win side on Dire this time has been way higher than the Radiant side. Way higher तो नहीं था, 7 से 10% था, 43 to 57 था, ठीक है? It is never more than 11%. But the question, the deal is कि जैसा गुप्ता जी ने बोला, गुप्ता जी कह रहे हैं कि हमेशा चेंज हो जाता है, रेडियंट और डायर दोनों होते हैं, और अगर बेस्ट ऑफ 3 चल रहा है, आपका दूसरा मैच चल रहा है, देन एस्टर को रेडियंट होना चाहिए था फॉर सम रीजन. और मैं गुप्ता जी को बोल रहा हूँ कि ये मैंने भी नोटिस करा है पहले, बट फिर आई थॉट कि लगता है कि अब बैलेंस कर दिया, कुछ तो होगा, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, बिकॉज पहले तो होता था, एक बार अगर कोई रेडियंट है तो अगले के अंदर दे आर गोइंग फॉर डायर. जैसे गुप्ता जी एक बात बताओ, मिड लेन के आसपास से जो वो हटाया है छोटा सा मिनी कैंप, उससे कितनी प्रॉब्लम होती होगी मिड वाले को? Is it not there anymore? Yeah, it's not. Radiant or Dire? दोनों उड़ा दिया. जो छोटे छोटे कैंप थे जहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि एक लेन क्रीप खराब हो गई तो अब वहाँ जाकर थोड़ा सा कंपनसेट करने की कोशिश करते थे, स्टैक करते थे टॉरेंट वगैरह से, अब वो है ही नहीं. So people like Sniper, Lina, Storm Spirit, all these guys should be affected with that. Because they now have to go back और पीछे जाकर फिर पुल करके फिर फार्म करो, तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, and then the XP is also wasted from the creeps. तो ऐसा अपडेट लाने की ज़रूरत ही क्या थी? क्या सोच के लाए होंगे कि मिड वाले का बिल्कुल बाइनरी पे हो जाए 1-0, हार गए तो हार गए, ये सीधा स्टैक करो, जंगल जाओ, लेन छोड़ो, एक्सपीरियंस से कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. आई थिंक उनको वो चाहते थे कि सपोर्ट्स कुछ और करे अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन द लेन, सो प्रोबेबली पुल फॉर द मिड गाय, स्टैकिंग एंड इट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो नेटवर्क स्विंग आता है उसके बाद स्टैक मारने के बाद काइंड ऑफ Beautiful initiation into that sacred arrow combination और nothing to say को फिर से मेल्ट करने की जद्दोजहद कोशिश. अरीना भी खोल दिया गया है, XXS का यहाँ पे एरो जाता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, बट एक दिया लीना 14 मिनट में बीके भी, जी हाँ, अभी भी जिंदा है, रिट्रीट पे हैं, और आई डोंट थिंक उनको पकड़ना इतना आसान होगा. एंड मार्स हैव बट मुझे एक चीज़ बताइए गुप्ता जी, अगर लेट्स सपोज लीना पे बीके भी नहीं होता, जो स्कैटर ब्लास्ट था, फिर दोनों को लगता मिरान और लीना को, क्या वो एक सिंगल पॉइंट टारगेट पे चलता है? सो आई थिंक लीना को बीके भी बाद में डिलीवर हुआ है, उसने पूरा डैमेज खाया, दैट्स व्हाई शी इज सो लो. बट क्या दैट्स इंटरेस्टिंग. यहाँ पे लीना की अभी तक एचपी कम हुई नहीं है. यू सी द बोट का केसेस आई है, यू सी द बोट ऑरा कि उनका वो सो टैंकी. और द ब्रेसर और ओगर ग्लव, बिकॉज यू नो द डील कि जितना स्ट्रेंथ आपका बढ़ता है, आपका मैजिक रेजिस्टेंस और स्टेटस रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है. ओके देन दैट फेरी फायर अटैक स्पीड. अभी तो लीना का ऐसा है, लीना का भी अपडेट पता है ना आपको गुप्ता जी क्या चल रहा है? पहले क्या होता था कि जितनी ज़्यादा आप स्किल चलाते हो, आपकी अटैक स्पीड उस हिसाब से बढ़ती थी. जैसे क्या करते थे लोग, जाके स्टन फर्स्ट स्किल नहीं. अब क्या है कि आप क्रीप पे मारो, क्रीप पे अगर 7 क्रीप्स है तो आपको उसके हिसाब से स्टैक मिलेगा. 7 स्टैक मिलेगा, ठीक है, उसके 7 स्टैक नहीं, उनके हिसाब से अगर उसमें से कोई एलाई अपोनेंट हीरो है तो उसका एक्स्ट्रा है, तो टॉप स्पीड 0.24 तक चली जाती है. एक सेकंड में 4 चांटे, और आपके पास डेडनेस वगैरह है, असॉल्ट है, देन समझ लीजिए कि सामने वाला तो खत्म. So that's why in last game. और ही का जो अटैक स्पीड और डैमेज था कंसीडर. दिस इज टाइनी एयरलाइंस बाय ज़ेंक्यू, बट नथिंग टू से को फाइनल जो हिट मिला बोबोका का, एंड 242 गोल्ड का यहाँ पे गेन आया. 5-5 का स्कोर है. एस्टर के पास 2000 गोल्ड का नेटवर्थ है. अभी पहला गेम एस्टर जीत चुकी है. अगर एक और गेम यहाँ पर एस्टर के फेवर में चला गया, then it means that the famous PSG.LGD, Paris Saint-Germain, they are out of international. I have a question. 2022. Yes, sir. Was Enigma last week? And Gyro last week? We were not there. Like draft के time पे आप दोनों थे. हाँ, draft like usually हमेशा Enigma या तो पहला pick हो जाता है, because from what I understand, कि Aster really wanted to go with Sven as a carry. But Enigma was picked, and that counters when but yes, Enigma counters when because BKB वगैरह जो भी है आपका, and he's a strength hero, तो more damage. So that's why they went with the Gyro carry as the second option, which is also good against Terrorblade. So, I mean, I think अभी तक like TI में हमने there's just been that one occasion थोड़ी देर पहले हमने देखा था where we saw Ame on that Sven, आयो Sven का combo उन्होंने execute किया था. But इससे पहले अब तक के जितने भी Svens हमने देखे, विशाल has been more about support Sven. Free Rosh. And fast Rosh. And yeah, exactly. And PSG.LGD really needed this. And Aster was somewhere down the line, nowhere in contention. And बहुत sneaky Rosh यहाँ पे ले लिया है.
एंड शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी PSG-LGD की. It was just that mid fight जहाँ पे दो supports मिले, from where we saw that switch around coming in, and then one after the other, Aster started getting that net worth lead. But I think PSG-LGD really needed this Rosh, ले लिया है. And what is their next set of objectives? For PSG? Yes. I think they get the tier 2 top first, and then they go get the tier 1 bottom. The very first pick ये हो रहा है, ये एक बार नहीं, ये मतलब अगर हमारा 25वां मैप है तो 24 मैप में अगर इनिग्मा उठाए तो पहले ही उठाया. आखिरी हमेशा वही होता है, या तो आपका ऑफलाइन या तो आपका कैरी. आई थिंक क्रैट इसमें आप भी सहमति रखोगे. अब तक हमारे मेन स्टेज में जितने एनिग्मास देखे हैं, फेल अपार्ट फ्रॉम जाइज एनिग्मा, जितने गेम्स जाई ने उठाए एनिग्मास, ही हैज मेड इट काउंट. बट उसके अपार्ट अभी तक कोई ऐसा एनिग्मा मैंने नहीं देखा है जिसने कुछ बहुत बड़े प्लेस किए हो. ये जो भी टीम ये वॉम्बो कॉम्बोस के चक्कर में जाती हुई है, नजर आई हैं, सबके फेल हुए हैं. हाँ. So in this game it doesn't matter if Enigma Black Hole डालता है कि नहीं, right? What matters is Eidolons and उसका third spell Midnight Pulse, because Aster has 2 strength heroes, one is core, and Gyrocopter is not good against Midnight Pulse as well. Plus TB, imagine TB hit कर रहा है तुम्हें Midnight Pulse में खड़े होकर fight करना है, that's a disaster. बट आई फील लाइक कि यार एक हीरो जिसका हाईली इतना अल्टीमेट, इतना बड़ा कूलडाउन वाला है, और जो ये कह रहे हैं ना जाय ने खेला था उस गेम के अंदर, जाय वाज नोवर. बाकी प्लेयर्स इतने ज़्यादा ओवर इनेबल्ड थे कि उन्होंने मतलब ब्लैक होल वाज अ ब्राउनी, एक्स्ट्रा पॉइंट था वो. बाकी लोग अच्छा खासा खेल रहे थे, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर अगर जाय है तो मटुम्बा मैन एंड मिकी ने अच्छा खेला होगा, तभी जाकर जाय को इतना मौका मिला. बट जितने भी एनिग्मा निकले हैं सारे के सारे बैंडे फेल. बट एवलांच यहाँ पे फेल होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे एक्स मार्क एंड बोर्ड का कॉम्बो स्टन तो हो रहा है थोड़ी देर के लिए. बट क्या यहाँ पर गुड अपॉर्चुनिटी फॉर जायरा. बट ओ माय गॉड, डिलीट कर दिया है यहाँ पे जिंक्यू को, और अरीना भी डाल दिया है. और यहाँ पे आता हुआ वो इनफेमस ब्लैक होल, जिसके बाहर से ओरी काफ़ी ज़्यादा डैमेज डिश आउट कर रहे हैं. और इसी के साथ फेथ बयान भी घर का रास्ता दिखा दिए गए हैं. अब आमे इज ऑन द रिट्रीट, बट राइट नाउ आई थिंक आस्टर को अपनी पॉजिटिव ट्रेड्स मिल चुकी है. बायबैक भी बेट अवे करवा दिया गया है, एंड नाउ दे गोना रिट्रीट. तो ये जो नेटवर्थ और ज़्यादा बढ़ने वाला है. The funny part is वो स्वेन को नहीं मार पाए. And Sven, अरे वो the skill build is very OP. He doesn't have anything. Windless लेके बैठा. उन्होंने अरे आइटम बिल्ड नहीं, स्किल बिल्ड. उन्होंने वॉर क्राई ले रखा है. वॉर क्राई मींस लॉट ऑफ मूवमेंट स्पीड एंड आर्मर, और इतनी आसानी से तो मरने से रहा. उसके बाद ये देखो ब्लैक होल भी कैसा था, ये मतलब गॉड ब्लेस अमेरिका एंड फेबियन, आई डोंट नो, मतलब इतना बड़ा कूल डाउन है. एटलीस्ट आई होप कि इंपॉर्टेंट हो जिसके अंदर कास्टर के मुंह से भी बात निकल जाए कि व्हाट अ ब्लैक होल. बट यहाँ पर भी जैसे फिक्सेस ने उस टाइम पे कवर किया तो लाइक यूज एक इनफेमस ब्लैक होल, जिसके अंदर एक बंदा अरीना की वॉल पे धक्के खा रहा है, उसको अंदर खींच रहे हैं. आई डाउट समटाइम, बट यहाँ पे फाइनली जिस स्वेन पे इरादे थे इस बार वो प्लेयर अफसोस यहाँ पर एग्जिट लेते हुए देखेंगे. जिंक्यू, एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट जो स्वेन कर रहा है वहाँ पर. इट मेक्स एलजीडी नाउ थिंक कि देयर विल बी कांस्टेंट जंगल एक्सप्लोरेशन बाय एस्टर एंड कांस्टेंट वॉर्डिंग होगी, तो वो डर बैठा रहेगा उनके लिए. एंड जो मिराना का किल था पिछले फाइट में, बाय द वे, इट वाज एन एक्सचेंज फॉर अ किल ऑन टाइम और ऑन स्नैपफायर, सो शी डिड नॉट डाई वेस्ट. बट आई थिंक हमें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग हिज फार्म ऑन, एंड could be like that last resort that PSG.LGD needs at this point. बट एक प्लेयर कितना ही कर लेगा फिक्सेस भाई जब टीवी हो सामने. बट और फिक्सेस, आई वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस. टीवी का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सा लगता है आपको? देखिए टीवी का जो सबसे मेटामॉर्फ, प्लीज. देखिए मेटामॉर्फोसिस नहीं, तो है वो तो है ही, वो जो फर्स्ट स्किल मारते हैं और ऐसे. अरे इट्स मेटामॉर्फ. हाँ वो उनको अलग रखता है. बट डोंट यू थिंक कि एक कैरी का स्पेशल एक्स फैक्टर उसका एक स्किल है जिसका हेवी कूल डाउन है, बाकी टाइम वो मीली बन जाता है. हाँ बट अभी देखिए ना, लाइक जस्ट लाइक ट्रोल एंटी स्मोक शिट. अब आगे 5 स्मोक, दे आर गेटिंग इनटू द रेडिएंट जोन. विल कंटिन्यू दिस टॉपिक लेटर once we cover up this smoke zone.
Lina, Gyro, Mars, Mirana and Sven, they're all set to destroy all the Radiants. But यहाँ पे जो purple है, Enigma शायद यहाँ पकड़े जा सकते हैं. If they don't know that threat is upon them. और ये देखिए, हमारे Sven है. Okay, buddy, happy birthday. Let's stop hammer and it will be over. बड़ी मेहनत करी फॉर द कोर 3 बट यहाँ पर उसी देर में जिंक्यू आते हैं, उन्होंने स्टंट टॉस किया बट मोने को करा, उनके बाद बीके भी था. अभी तक कॉल्डन लगाए, कॉल्डन लगाया, उसके बाद फ्लैकन एंड रॉकेट बराज भी एक्सपेक्टेड है बट नथिंग टू से, ही इज नॉट कॉन्फिडेंट. पर उतनी देर में वो गोलम को अटैक करे बट नाइस बीके भी टाइमिंग, उन्होंने स्पीयर को जो डॉज किया है. दिस कॉम्बो लेट्स सी कि क्या यहाँ पर वो कंफर्म कर सकते हैं किल या नहीं. व्हाटएवर केसेस काफी ज्यादा डैमेज दे रहे बट आई डोंट नो हाउ दिस जायरोकॉप्टर इज डिनाइड. Is denying to die. वो कहना मैं नहीं मरता. कितनी कम एचपी में ही सर्वाइव. अरे बेचारे ओरी वो इल्यूजन्स को धरे के धरे मारते रह गए और यहाँ पे आएंगे हमारे प्यारे स्नैपफायर, वो किल लेंगे बट जरूर अपना ट्रेड से यहाँ पे लेते जाएंगे. सो 1 for a 3 ट्रेड अभी भी एस्टर को फेवर करता हुआ बट दिस माइट ऑल चेंज बिकॉज नाउ द जायरो एंड द लीना दे हैव फॉलन डाउन. ये आई थिंक इसकी दरकार थी यहाँ पे टीम PSG.LGD को काफी ज्यादा. And that was a buyback from Enigma. Yeah. Oh god, I'm telling you, this Enigma picking, you know, I just don't like it until unless you go ham with some black holes. हर because black hole हो गया, RP हो गई, ravage हो गया, ये ऐसे अल्टीमेट है जो गेम बदल सकते हैं. बट गेम तब बदले ना जब 3-4 लोग आए, जैसे कोलैप्स है उसमें 2021 के अंदर स्क्रूअर मार के लोगों को परेशान करते थे. रिमेंबर ओजी के जो सुमेल को उनको टियर 3 से सीधा बेस ले गए थे. ऐसा कोई खेले तो बात है, अराइज जैसा खेले तो कोई बात है. बट यहाँ पर एक ब्लैक होल, दैट्स नॉट फन, दैट्स नॉट द रियल वर्थ ऑफ दैट हीरो. कुंका रियली वांटेड गायरो हियर, काफी डीप एंड व्हाट एन अरीना वाज ब्लॉक्ड आउट. टेरब्लेड टू कम इन टू द फाइट एंड देन उन्होंने कुंका मार दिया. At this moment they should have backed because एक buyback हो चुका है. They have used his first BKB as well. थोड़ा greed and then they lose lead. The only good part is कि यहाँ पे ओरी मरा तभी जाके मैं बोल सकता हूँ PSG को कुछ फायदा हुआ होगा, वरना तो उसके बाद ये देखिए डैमेज देखिए कितना. This terror blade is literally scratching this Mars. Look at the positioning. I think यहाँ पे Zinkyu made some really nice plays because Mone kind of thought कि शायद फ्लैग कैनन्स वगैरह यूज करके कैटलिंग गन सस्टेन कर जाएंगे बट दैट स्टंट टॉस अगेन प्रूविंग प्योरली पिवटल. So you remember मैंने बोला था कि the PSG should go get the tier 2 top and then tier 1 bottom. Now this is what Aster would be doing. Now they will go regroup and go top because ये जंगल उनका हो चुका है and they don't need it anymore. They will regain their own jungle first and then top से push करना start करेंगे so that the next Roshan which is going to spawn in next 4-5 minutes उसके लिए contest करता है. So Silver Edge on Lina has been picked up. तो यहाँ पे जैसे हम वापस से हमारे डिस्कशन पे आ रहे हैं, जो क्रैट के पास सवाल था, एक ट्रिक क्वेश्चन पूछा था लाइक कि टीवी का सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या होता है. आइडियली मेटामॉर्फोसिस रहता है बट सिंस क्रैट ने ये पूछा था कुछ ना कुछ उनके पंडोरा के पिटारे में रहता है राज. मैंने आंसर भी बताया तुझे. हाँ बट देख जैसे स्वेन है, स्वेन का गॉड स्ट्रेंथ उसको सबसे अलग रखता है, वरना अगर उसका गॉड स्ट्रेंथ हटा दो फिर सपोर्ट बन जाएगा. वो वॉर क्राई वगैरह करके एक स्टन हो गया. यस और नो. अब एंटी में जैसे जो कैरेक्टर है, ठीक है, उसके पास ऐसा कुछ स्पेशल नहीं, ही इज ऑल टाइम हाई. मतलब ऐसा कुछ नहीं, समझ लो, हाई ऑन लाइफ मैन, हाई ऑन एनर्जी, हाई ऑन क्रीप्स. फेयर इनफ. ठीक है, तो अब सेम विद अब फेसलेस वॉइड है, मेटामॉर्फोसिस वाला टेरर रेड है, इनके पास एक स्पेशल स्किल है तभी जाके. अब जैसे स्पेक्टर है, स्पेक्टर के पास कुछ अलग नहीं है, ठीक है. स्पेक्टर का डिस्पर्जन डेसोलेट इतना ओपी स्किल है जिससे उसको अलग से अलग रखता है. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि टेरर ब्लेड हो गया, स्वेन हो गया, लाइक दे टोटली डिपेंड. बिकॉज काफी बार आपका मेटामॉर्फिज्म यूज हो रहा है, भगवान ना करे आपको डिसेबल करके कोई मार दे, आपको बायबैक करना पड़ा, आपके पास वो स्किल ही नहीं है. लाइक डोंट फील लाइक ये बेकार चीज है यार. बेकार तो नहीं है, मतलब देखो ये उस हीरो किट उसी हिसाब से बेस्ड. एंड यस हिट रेट की भी बात करें थोड़ा सा बायस रहेगा क्योंकि ही इज ऑलवेज एन एंटी मेज गाय एंड शी विल स्पॉट रोशन. जी हां, तुम हमेशा ना एक ऐसा एंगल पकड़ते हो जिससे कि तुम दोनों मुझे पकड़ सको. ठीक है, यही तो प्यार है हम दोनों के बीच का. बट ये देखिए यहाँ पे विराट कोहली और उन्होंने सीधा लाल हो गए हैं, वो बिल्कुल गुस्से में आके दे भटाभट देने की कोशिश है. एंड सी दैट अटैक स्पीड ऑफ हो रही हर सेकंड, मतलब 3 से 4 फटके आराम से छूट रहे हैं. द डैमेज
रोशान इज गेटिंग मेल्टेड डाउन और रोशान उठाया, इससे ये सेकंड रोशान है, इसका मतलब इनके साथ एक एजेस ऑफ इमॉर्टैलिटी एंड आपको क्या मिलेगा बेबी? नाउ देखो रुको क्या मिलेगा एजेस के साथ? कायदे से तो चीज मिलना चाहिए। अरे आप मेरे यहाँ रहे, एक काम करना, कभी बंदूक है ना तो बिल्कुल आईब्रोज के बीच में मार देना मेरे। देखिए शार्ट मिलेगा सेकंड में, थर्ड में आता है चीज। ओके चलिए, थर्ड में रिफ्रेशर आता है, फोर्थ में, थर्ड में रिफ्रेशर आता है, फोर्थ। रुक जाओ अभी दिखाता हूं, मेरे पास है, I'll check। अरे we have the internet। अरे ये तो मैं भी कर सकता था। Aster pushing for a team fight probably, so if they win this they probably get tier 3 mid। चलिए आई थिंक इस पॉइंट पे BKB बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है, स्पेशली जब टाइनी के स्टंट टॉसेस बहुत ज़्यादा अनोइंग हो चुके हैं। कुंका है मतलब या कुनका हैविंग एन असॉल्ट, तो इसका मतलब टेरर ब्लेड के भी चांटे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा डैमेज पड़ने वाले हैं। सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, आई वांट टू शो यू वन थिंग। व्हाट्स दिस? ये है शार्ड। हां शार्ड ही था। थैंक यू। Oh, DD rune denied by TB's illusion। They don't want कि यहाँ पर ये you know Gyro या लीना पे आ जाए, because if Lina found a Titan Silver for Gyro, a good neutral item। Yes। Yeah। But I think उन्होंने stash में already डाल रखा है, but ये जो दूसरा neutral item है ना double attack वाला, it's a fun neutral item। उस दिन मैं I was playing Shadowfiend, मैं Silver Edge करके किसी को मारने जा रहा था और I got a double kill, because support को second attack पड़ गया। It's fun। Crystal is he going for a butterfly? Who? Gyro? अगर क्रिस्टलिस है उनके पास अभी, no he's going for MKV, नहीं तो लीना है, but I didn't see the inventory for Javelin था उसमें। Okay, अगर उन्होंने क्रिस्टलिस लिया है तो हाई चांसेस है कि अब क्रिस्टलिस के साथ ज़्यादातर लोग इको से वो बनाते हैं सिल्वर एज, डेल्टस ज़्यादा अवॉइड ही कर रहे हैं, बट अब जो हमारे टेरर ब्लेड है he will be using all his reflections and all the images। It's interesting कि PSG फाइट करना चाहती है यहाँ पर, because they already know कि Gyro के पास एजेस भी है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, 7000 की नेटवर्थ अभी भी ऊपर है, तो मतलब 7000 मतलब एक ना एक आपका जो कैरी है उसमें, बट टेरर ब्लेड का जो आइटम है नेटवर्थ देखिए सबसे ऊपर है, डिस्पाइट ऑन द लूजिंग एंड। मतलब अभी जो बटरफ्लाई कैट जायरो ईगल सॉन्ग आ गया। अरे क्रिस्टलिस से क्या बना रहे हो? No, I think what he needs is more damage, because they have Sven already। Yes। एक सिचुएशनल सा है जैसे याशा वगैरह खरीदते हैं, बट हाई चांसेस है कि अगर लगेगा डैमेज की जरूरत है, एक कैन कन्वर्ट टू डेडलेस, एल्स सिल्वर एज भी हो सकता है थोड़ा बिग। TBS definitely farmed, yeah, jacked if they let him hit, he will hit really hard। Nothing to say के पास I saw that there is उनके पास assault है, तो armor की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। I wanna see, but trust me, this game can easily turn to the PSG side। अगर जो हमारे फेजबियान भाई साहब हैं TI6 विनर हैं, अगर वो एक प्रोडक्टिव सा ब्लैक होल मार देते हैं जिसके अंदर आई डोंट वांट मेन कोर्स, आप मार्स को ही ले लो, आप स्वेन को ले लो, अगर इनको भी उड़ा दिया, अरीना के बिना गेम नहीं खेल सकते वो, दे नीड अरीना एट फॉर शॉट। अब ये स्प्लिट पुश करने की एक नाकाम कोशिश। इट विल बी ऑलवेज एस्टर जो इनिशिएट करेगी, बिकॉज़ ऑफ मार्स एंड ओ वो फर्स्ट किल टीबी का। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि प्लेइंग अगेंस्ट अ टीबी, आपका कैरी जितना फार्म हो रहा है इज गोना हर्ट यू मोर। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंटी मैच, बिकॉज़ वो जो माना बर्न होता है ना, बिकॉज़ एंटी मैच का फर्स्ट किल ये नहीं कहता माना बर्न होगा, उसके हिसाब से माना बर्न के हिसाब से डैमेज भी होगा। लेट्स सपोज आपके पास 400 माना भी बर्न होगा, बट आपकी एचपी भी हिसाब से जाएगी। बट अगर आपके पास माना ही नहीं है ना, तो डैमेज लिटरली डीके जैसे प्लेयर जिनके पास माना नहीं है एंटी मैच स्क्रैच करता है। बट so if you see the map, they are planning on what to do next। एक चीज़ है, लाइक मिराना हैज़ द जेम एंड शी हैज़ टू स्टे अलाइव, सो इट्स द सेकंड टाइम हम लोग देख रहे हैं कि दे आर मेकिंग दोस जेम मूव्स, एंड वी हैवंट सीन मिराना काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए। पिछले गेम में हमने देखा था इट वाज ऑन XXS, बट एस्टर की जो विजन रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ही अच्छा रख रहे हैं। मुने
getting caught and in a very precarious spot though. अभी भी BKB नहीं on करना चाह रहे. It has the Aegis luxury. Finally अपना ultimate खोल दिया गया है. Just going deep into the enemy lines और damage देने के लिए पूरा प्रयास रह रहा है और he is actually dishing out damage. अभी तक Sunder का इस्तेमाल नहीं हुआ है. लीना का pick off और इसी के साथ आमे को मिल चुका है double kill. Finally अरीना को यहाँ पे खोल दिया गया. They are trying to focus down. The TP do not want to give him the chance to make a use of that Sunder and hasn't been given the luxury. अब now team PSG.LGD they're on a retreat. Nothing to say. आगे तो आ रहे हैं. What is the buyback status? Yes, TV के पास buyback मौजूद जरूर है, but Krat, I think अभी आपका जो point है, तीनों के पास है buyback. We will have to consider that. So it was so smart from both the teams. उन्होंने पहले गायरो को मारा बहुत. When he was at 15% HP, उन्होंने मारना छोड़ दिया because they knew कि उसके पास Aegis है and he'll respawn again. So smart from Aster that उन्होंने पहले BKB pop करवाया and then they went on the other people. उसके बाद उन्होंने TB focus करना चालू किया. So if you see this fight again, they went on to Gyro, Mara, and then they left him because they know कि उसके पास Aegis है and they started hitting other people. Like no damage given then, to Mars. Mars see, is damn no one is hitting Gyro right now. He's trying, but उनके पास butter है. अभी इन्होंने BKB pop करवाया, started killing other people. BKB गया है and then Mars goes in. There you go. No BKB, he can't do anything. Sven comes in, puts a stun, and he's dead. Small little details that change everything. Yes. Yep. That's Dota. That's life. That's life. Mr. Sharma, real ID चाहिए. They're not doing anything. Everyone is respawned. Yeah, confused. कुछ भी वो ट्राई कर रहे हैं because Aegis was popped. The very first thing they need is एक तो MKB तो चाहिए कुछ भी करके आप टीवी को because अगर किसी को मारने का है यहाँ पर अगर जायरो के साथ मैन फाइट तो करनी पड़ेगी कुछ भी कर लो और उसके लिए MKB चाहिए because बटरफ्लाई के वजह से 33% जो अभी इवेजन मिल रहा है वो चुभ रहा है टीवी को. So it was ये इस चीज के लिए था he had to go butterfly क्योंकि it is also Lina जो उसको मार रही है right. Plus Gyro. I think Lina या किसी ने MKB भी pick किया था. नहीं, Lina should be making MKB. She has already made it. She already has one. But Butter यहाँ पर मेरे ख्याल से उसने नहीं बनाया टेरर ब्लेड ने. Butter बनाया है जायरोकॉप्टर ने. तो लीना का MKB मे बी इज ऑलरेडी प्लान की अगर गया था तो हाँ भाई. Yeah. So Butter doesn't make sense because he already has a Skadi. 2 defensive item नहीं काम करेंगे. For sure he'll just end up wasting a slot. But he queued it up, so it will be interesting. He picks it up. I think an ideal choice for TB would be a Blink, so that he can position himself perfectly. But Swift Link. Yeah, and change it to Swift Link. He's going for a. I told you that like people will go for that, you know, Silver Edge. अब Swift Link में क्या होता है? Basically जब भी आप उसको use करते हो तो आपको temporary agility मिलती है, आपका movement speed बढ़ता है और आपका attack speed बढ़ती है for the time. So if you get agility, your armor increases as well. ये मैंने तुझे समझाया था जॉनी भाई साहब. Yes. So I think इस point पे we are witnessing 10-man smoke. दोनों ही तरफ where Aster Radiant के जंगल में. See, they want to go the other way around. If you see the map, everyone is pointing there. अब PSG.LGD their smokes have been revealed. This is a death trap और यहाँ पे Mars के arena के अंदर पकड़े गए हैं खुले आम Zinkyu. तो अब यहाँ पे एक और पिक भी मिल जाएगा and that's going to be the 2 supports. अभी भी आमे छिपे हुए थे, अभी उनको भी spot कर दिया जाएगा courtesy to that beautiful gem that they had. Damage देखिए output इस बार TB की काफी ज़्यादा आ रही है but it is on the Mars and जी हाँ जैसे आपने कहा BKB waste but फिर से एक और arena डालने की कोशिश इसके अंदर इस बार nothing to say. BKB तो इन्होंने चला रखा है फिलहाल के लिए. पेट बियान का बहुत ही बेहतरीन ब्लैक होल और yes आमे डैमेज डील करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं इसी के साथ यहाँ पे उनको मोने को पिक करना शायद एक कमबैक की. Aster can still win this fight. If they get one stun. ललकार हो सकती है. They need spear to be connected. Yes, they have done it. Wow. यहाँ पे एक play तो जाएगा. I think that is nothing to say जो यहाँ पे चलेंगे. But that Ori, the damage and everything. Ori ultra kill. And that is a very Roshan is spawning right now. So a team wipe plus a buyback perfect timing from Snapfire.
Perfect timing. जब ऊपर वाला आपके साथ है, then डरने की क्या बात है? Krat, who do you want to win though? Aster or PSG? May the best team win, I believe. Because end of the day, I wanted PSG to win international, but after this, I'll start supporting my 11-time international attendee. So for PSG, उनके लिए काफी sense बन जाता if they would have just backed out. But with that, it was a sure shot mid barracks gone. Because Terrorblade ने already metamorphosis use कर लिया था, and when you lose 2 people in a team fight and आगे वालों के पांचों जिंदा है, it's just back off and give up what they want. Aster के लिए हमें अपना गाना गा देना चाहिए. नहीं. They are succeeding. They are doing well. Okay. Screw them. They go Rosh now. अरे ऐसे मत बोला करो. Pick up the refresher. Did you see that Roshan? हाँ. Which Roshan? तीसरा Roshan. Oh my God. चौथा रोशन. अरे कोरियर बेबी रोशन. अच्छा बेबी रोशन. Yeah, see. When you lose 2 people here, you just back off. And TB, it was so beautifully placed कि TB किसी को मार ही नहीं सकता क्योंकि पूरी टीम इस तरफ है और TB उस तरफ है. Now they just wait for something. I don't know what. 5-on-2. TB tries to kill him off, but he has a great defense. BKB wasted completely. Boat wasted completely. Yeah, there you go. This was a good move from Tiny and Enigma, but TB था ही नहीं मारने के लिए. So TB had to figure out कि कहाँ से मारूँ. But they got it. But yeah, they got 2 kills, which is decent. And then Lina is hitting like a truck. अरे machine gun चल रही है. Okay then. So यहाँ पे Ganem Scepter भी आ गया. Blessing इसका मतलब अब जो Flak Cannons हो गए, I think it's still the same. Flak Cannon double हो जाएंगे. Or something else. Okay, he was supposed to teach us. Who got it? It was Boboka. Boboka को secret arrow को तो मुझे पता है क्या होगा. जहाँ से secret arrow जाएगा वहाँ पे star fall होगा. It's not a big deal. मतलब game को बहुत complex करा है. Dota की जो वो है ना, Cyber Mad और Icework दोनों बैठ कर गेम के अंदर जो चेंजेस लाते हैं, डायनामिक ला देते हैं पूरे. अब जायरोकॉप्टर ने लिया ही नहीं लिया, या जायरोकॉप्टर के पास शार्ट भी है और उसके बाद उनके पास गैनम सेप्टर ब्लेसिंग भी है और उन्होंने सेप्टर अभी तक खाई नहीं. इसका मतलब ये सेप्टर जो फ्री का आया था ये इन्होंने किसी को गिफ्ट किया. आई थिंक बोबो का. या व्हाट डज टीबी गो नेक्स्ट? टीबी के लिए उनके पास स्लॉट तो है नहीं. जूता जाएगा, जूता जाके वही आएगा. स्विफ्ट ब्लिंक आना चाहिए, या स्विफ्ट ब्लिंक नहीं आया तो एमके भी आएगा. उसके सिवाय कुछ और नहीं आ सकता. बिकॉज दिस टीबी कैन डिस्ट्रॉय एनीवन विद दैट. व्हाट अबाउट अ रिफ्रेशर? वो एक एक्स्ट्रा आइटम हो सकता है. वो अभी नहीं आएगा, वो बाद में आएगा, बट आएगा मतलब वो अभी नहीं आएगा. क्योंकि अभी के लिए जो मेन चीज़ वो है कि जैसी मेटा खोले ना तो लोगों को घर भागने का और डैमेज बहुत ज़्यादा होता है. इट्स नॉट इजी टू. अब आप खुद नोटिस करिए, देखिए टाइम कितना हो गया. 40 मिनट हो गया. आपके मिड के पास अभी भी 4 स्लॉट है जिसमें 1400 रुपये का जूता है, एक 500 रुपये की 500 गोल्ड का मैजिक बॉटल, 725 रुपये की बॉटल है. और वहीं पे अगर आप ओरी के साथ कंपेयर करेंगे, ओरी ऑलमोस्ट 5 स्लॉट जैक्ड है. तो यहाँ पर नथिंग टू से का भी जो इम्पैक्ट है गेम के अंदर थोड़ा सा, जस्ट बिकॉज उनके पास असॉल्ट है उनका इम्पैक्ट है, वरना मतलब he's queuing up MKB. But do you think कि उसे 4 स्टार अपग्रेड Hurricane Pike? Yeah, Hurricane Pike. But वही है ना ब्रो, like end of the day the only damage giver from the team is for now is Terrorblade. कुंका का डैमेज नहीं है अभी. कुंका कुछ खास नहीं कर पा रहा है. कुंका सपोर्टो को मारेगा बाबा. अभी जो मेन टारगेट है वो मार्स है जो जैक्ड है, ओरी इज जैक्ड एंड मोने इज जैक्ड. इन तीनों को अकेले कैसे टेरर मारेगा? So Kunkka is going for a scepter. इसका मतलब he has an MKB. इसका मतलब सुनामी आएगी हमारे डोटा के मैप पे. I think Rat at this point PSG.LGD के लिए the only window of opening will be to try and play as much around that Enigma black hole. So Faith Bian ने जो पिछले फाइट में जो ब्लैक होल इनिशिएशन दिया था, he's got to do more of it and even better black holes. क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पे उनके कोर्स मेल्टडाउन हो गए थे, स्पेशली मोने. और लास्ट टाइम जैसे विशाल ने डिस्कस किया था, इट वाज डिफिकल्ट फॉर टीबी टू ट्राई एंड फाइंड अ गुड एवेन्यू टू स्टार्ट फायरिंग राइट क्लिक्स. बट दिस इज वेयर यहाँ पे एक जोनिंग अरीना खुला दिया गया है और इसी के सहारे खुद का यहीं पे पत्ता कट मिडनाइट पर्स डाल दिया गया है. अभी तक जीजी कॉल आउट तो नहीं हुआ है फिलहाल के लिए. आई एम प्रीटी श्योर जिंक्यू ने पिछले फाइट में बायबैक किया था, तो इस बार बायबैक्स अवेलेबल नहीं है. सिंगल मैन यहाँ पे पकड़ा है, ओरी को मार दिया. ओरी का भी बायबैक आ चुका है इस फाइट के अंदर. टीबी इज डूइंग सम मैसिव अमाउंट ऑफ डैमेज. यहाँ पे जायरो स्टिल स्टिकिंग ऑन, फाइटिंग रियली हार्ड.
And with that being said, 4 players यहाँ पे खत्म हो चुके हैं इकलौते Snapfire बचे हैं और GG has been the call and Aster moves on और ये शायद Faith Bian और आमे का आखिरी गेम था TI के अंदर और उनके प्रोफेशनल डोटा करियर के अंदर और एक लंबा रन चला PSG.LGD का one of the most dominant teams रही थी बट जब अगली साल हम आएंगे PSG.LGD के साथ तब शायद 2-3 अलग प्लेयर्स रहेंगे। यहाँ से किसका वो नहीं आप कौन सी पोस्ट डलवाते हैं? नहीं थैंक यू फॉर सर्विस। थैंक यू फॉर सर्विस। अरे वो तो वैसे ही रिटायरमेंट पोस्ट आएंगे कि दे नीडेड कॉज पैनल ने भी बोल दिया था कि ये टीम नए पैच को अपडेट मतलब पूरा ना अडैप्ट नहीं कर पाई है बट वी विल बी वेरी स्टूपिड अगर हम इनको बोलेंगे कि ये बहुत मतलब वो प्लेयरों में दम नहीं है। प्लेयर्स आर खेले तो बहुत अच्छे हैं। आई स्टिल थिंक कि जो हमारी 2018-19 वाली PSG.LGD थी वो सबसे लाजवाब थी। वो जिसके अंदर मिड सॉमनस खेलते थे, कैरी आमे था, हमारा ऑफ रेंज चालिस था, सपोर्ट के अंदर F5 खेलते थे और आखिरी के अंदर इट वाज वाई। वो सबसे बढ़िया टीम थी। Zinky and all they are good but वो लाइनअप का एक अलग ही एक सिस्टम था जो वो they got beaten by OG both times right? एक बारी फाइनल्स एक बारी अरे 2018 के अंदर I believe Arrow you were there we were watching in the pub storm हो रहा था एंड हम थर्ड गेम के अंदर घर चले गए। मैंने कहा अब तो ये गेम बचा ही नहीं बिकॉज PSG.LGD was literally thrashing OG। हम अगले दिन सुबह आए और बोले OG जीत गई ऐसा था। हम सब घर चले गए थे लिटरली हमने मतलब टोपी ओपी फेंक दी बिकॉज हमने ESL की ओरिजिनल मर्चेंडाइज सपोर्ट कर रहे थे हम OG चलो हम जा रहे घर हमने नहीं देखना। कल सुबह देखा OG जीत गई और हमने फिर उसके बाद हाइलाइट्स देखे कि ऐसा क्या किया था। देन वी गॉट टू नो कि जेरेक्स वगैरह ने अलग ही मतलब धुआं डाल दिया था। फन यही तो है डोटा कभी यही है डोटा यही है जिंदगी। बट 19 वाला यू नो 19 वाला तो ऐसा था कि मतलब एक हाथ में थे वर हैविंग केक एंड पिज़्ज़ा और साथ में डोटा भी चल रहे जीतते हुए जा रहे 2-0 2-0 2-0 3-1 आई रिमेंबर वो अगर वो नोटेल ने बायबैक अगर बायबैक करवा लिया होता है आना का जो जिसके अंदर वीहा खेल रहा था मीपो और मिरेकल खेल रहा था जो पहला गेम बायबैक की वजह से आ रहे थे आना के अगर वो बायबैक करवा लेता वो 3-0 होता लिख के दे रहा हूं बिकॉज़ वो कमबैक आने वाला था। कमबैक आ चुका था ऑलमोस्ट यहां तक आ गए थे। कौन सी टीम थे लिक्विड के आई रिमेंबर मैं तो पीसीआर में बैठ के देख रहा था तब हमारे कंट्रोल रूम में तब मैं हाइलाइट्स ही काटता था और हाइलाइट्स की बात करें तो हाइलाइट्स के ऊपर नजर डालते हैं। देखिए हाइलाइट्स काटते काटते दुनिया की काटते काटते आप कास्टर भी बन चुके हैं टीआई का। मॉडर्न टैलेंट यू नो तराशे जाते हैं। हां हायरार्की होती है आप हाइलाइट से शुरू करते हैं हमेशा। आई लाइक द वे कि यहां पर वो स्वेन नहीं मार पाए प्रैंक हो गया हल्का सा प्रैंक हो गया एंड दिस इज द पॉइंट वेयर वी फेल्ट विशाल को मजा आ रहा है। विशाल को मजा आ रहा है। विशाल एंजॉयिंग सम विशाल हैज अ लॉट ऑफ वर्क विशाल कह रहा है कि व्हाट मेरा डोटा खेलना पसंद है और यहाँ पे मुझे बैठा के डोटा दिखा रहे हैं और क्या चाहिए। विशाल को डार्क साइड पे ले लेते हैं। विशाल को डार्क साइड पे ले लेते हैं। लेट्स मेक हिम अ टैलेंट। जी हां आई थिंक इट्स टाइम एंड अ डबल स्टन हियर वाओ बट आई फील बैड फॉर आर्मी मैन। आखिरी साल हो गए हर बार लाइक ये इतनी जल्दी नहीं जाने वाले। ये तो बोल तो दिया था अभी थोड़ी देर पहले। लैनम्स अपने करियर में 3 से 4 बार रिटायर हुए। जाओएट इन सब का रोज का होता है। दे ऑलवेज आई डोंट वांट बट इंडिया में भी बहुत सारे हमारे पीसी स्पोर्ट्स में जो हर दूसरे दिन आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन विद द लाइफ विद द ग्रेटर अचीवमेंट्स वगैरह। लाइक अगले हफ्ते गली का टूर्नामेंट आ रहा है 10,000 का उसमें वापस आ जाते हैं फिर। आई विल मेक अ प्रेडिक्शन एस्टर इज आउट टुमारो। अरे रुकिए जरा हु आर दे प्लेइंग No idea yet. Aster will be playing the loser. No. They will be playing. अभी इनका next अभी इनका ये दूसरा BO3 था ना? हाँ. ठीक है. अभी इनका आखिरी में मैच हो रहा है. नहीं, ये तीसरा BO3 था. This is the third. हाँ. तीसरा था. इसके बाद एक और है बस. Okay then. इसका अभी मैच. Okay, you guys can continue. मैं अभी देख के बता दूँगा. I mean आप अभी भी देख सकते हैं. दुनिया में देख रही है. करोड़ों लोग जो भी इस ब्रॉडकास्ट में शामिल हुए हैं ऊपर वाले से डर फर्स्ट ऑफ ऑल ओके ऊपर देर अंधेर नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू थैंक विशाल फॉर जॉइनिंग अस ऑन द डेस्क बिकॉज़ विशाल के पास बहुत सारा काम है एंड वो अपना काम छोड़ के हमारी हेल्प कर रहे हैं बिकॉज़ प्लीज शो द ऑडियंस दैट व्हाट अ नाइस किक्स like recently he went Riyadh and he did some crazy shopping. Let's not talk about it. Why? अरे बहुत मेमोरीज हैं और हाँ बस ये प्रोड्यूसर हमारे कान पे कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे अच्छी बातें उठे हुए हैं। बस इन जूतों पे बस वो डीडी लगा दो वैल्यू 10 लाख की हो जाएगी। डीडी क्या होता है? 80,000 का जूता। मुझे लगा डबल 80,000 8 लाख के हो जाएंगे फिर घर जाएगा। घर जाएगा
सब बोनस जाएगा। बट आई एम वेरी हैप्पी कि हम सोफे पे 4 लोग बैठे हैं, भरा भरा लग रहा है। अब सोच के देखो यहाँ पे भी होता तो क्या अलग ही महफिल। आपको इस बात का ज्यादा अच्छा लगेगा कि फाइनली कोई आपके लेवल पे डोटा बात करने के लिए है, वरना तो ये और मेरे से क्या बात करेंगे। मतलब मैं चाहता हूँ कि क्रैट कम्पीट कर पाए कभी-कभार। बिना हैक्स के एक बारी क्रैट के साथ अरे आज तो मेरा मतलब सब कुछ बंद है यार, आपने खुद देखा होगा, आप ही तो उस ग्रुप में शामिल हो। मैं तो बस इसको ना वो दे दो हल्की सी ना, वो ऊन बुनने के लिए, ये उसमें भी लग जाएंगे। ठीक है, बट आई थिंक ये जो हमने मतलब क्रैट कोशिश अच्छी करते हैं, मतलब जो इनके आइडियाज हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब वेरी सिंपल। हाँ, होराइजन बड़ा नहीं है, बट जैसा लाइक दिस इज टिपिकल दिल्ली मेंटालिटी। मतलब अगर सूरज वेस्ट से ईस्ट होता है तो वेस्ट से ईस्ट होता है। अच्छा, अगर ईस्ट से वेस्ट तुमने बोल दिया जाओ तो मोमोज खाओ। बहुत ही बढ़िया। मतलब मोमोज में बुरा क्या है फिक्सेस, ये बताइए। कुछ नहीं बुरा है, प्रॉब्लम है मेरे के क्रैट इन अ नटशेल क्या? हाँ ठीक है, ये एक शो होना चाहिए, दिस शुड बी अ शो। This is not the right place. रूल इज सिंपल, मैं भी कहीं से देख के सीखता हूँ और मैं अच्छे लोगों से सीखता हूँ, और जो देखिए रूल्स हैं बड़े मस्त होते हैं। वही बात है, जो आप अच्छे कहते हो वो ये अब एक आपका पॉडकास्ट बन चुका है, ये एक परसेप्शन होता है। दुनिया बहुत सारी नो, इट्स लाइक अ विबग्योर जो कॉन्सेप्ट होता है, स्पेक्ट्रम। I think for the producer we can just close this and make this a podcast. अरे कुछ भी करा देंगे, आप बताइए, स्क्रीन चेंज करा देंगे। आपको और मेरे को पकड़ लिया जाएगा, so I think we need to talk about the international. Yeah. चलिए अंग्रेजी डेस्क पे 2-0 swipe. 2-0 swipe, बट अगले मैचअप की तरफ बढ़ते हैं। अगर थोड़ा सा सुनते हैं कि इंग्लिश कास्टर्स क्या बोल रहे हैं, बिकॉज़ अगली 2 टीम स्टेज पर आ चुकी हैं बॉयज। Team Liquid representing Europe, Matumbaman, Mickey, Zai, Boxy and Insania. A wonderful tournament so far. And let's see if they can keep it up and move on to the final stage, because they're up against Thunder Awaken. Thunder Awaken, the final South American team here. Picaz, Dark Mago, Sacred, Matthew, and Pandaboo. So far, they've only really impressed. They lost the secret, and that is why they are here. Liquid obviously going into the lower bracket a little bit earlier, so Thunder Awaken have been the stronger team throughout the tournament, but Liquid did come off a win today, beating OG, which is a nice bit of confidence. But Thunder Awaken, what are they bringing to the table? Aggression. Yeah. One word, simple answer, it's aggression. And they are just ruthless in regards to when they have the heroes that they want to play. If they get a lead in laning phase, they utilize that lead and they always have numbers advantage in every fight. If they see an opportunity, they're going to bring 3, 4, even 5 heroes to an early engagement, and just that momentum can offset opponents. I guess the flip side is Liquid, they're kind of like the European version of that. They're equally as aggressive. They want to look for early towers. They want to look for early fights. So we've got 2 very aggressive teams coming up into this series. And they're definitely carrying the momentum coming from the first series versus OG. Well, go on, sorry. Yeah, I just feel that even though they are carrying the momentum, like Boxy said, OG didn't really perform to the highest standards, to what Liquid even expects from them. So we can't look at that game as a litmus test of Liquid's strength at the moment. Certainly not a warm-up when you're in the the final 8 of the international. But yeah, you're right. OG unfortunately did lead today's stage of the international in what wasn't what they would consider their best fashion. I think PSG.LGD, Aster were just putting on a performance. So not sure they're obviously going to be disappointed. But one of these 2 teams could be leaving us, and we are with Thunder Awaken here. But they both like to fight, as you mentioned, and that was something that Liquid said. Is like, yeah, we're looking forward to fighting OG, and then OG did really, weren't in a position where they could have that fight. So, but yeah, sure, they're warmed up. They've got a little bit of momentum, but how much is it really? I'm just mostly worried for Thunder Awaken from their last series, because we talk about their involvement and how they want to fight, but it felt like in their match against Secret, especially that one where they were playing the Tidehunter, they didn't have a proper plan around how they wanted to use the Ravage and incorporate their offlaner, and as a result, Sacred had a pretty rough game, and he was their main team fight spell. So if you're kind of feeling like that, I don't know whether it's nerves, the pressure, if it's just not communicating properly. That's the sort of stuff they need to make sure they have fixed in this series, because Liquid will eat you alive if you give them a single chance to do so. They already did that to OG, right? Another stack of young blood
pretty much just coming in and being probably damaged a little bit by the nerves, right, when it comes to their performance. It can happen the same to the Thunder Awaken squad. And I literally just found this out, but Thunder Awaken, before the Secret Series, 8 of the games that they played, 7 of them were against Shadow Fiend. Like, I don't know where I'm taking this, but it's just like, when you think about their success, they played against a hero that was very popular in group stage, then it fell off heavily during playoffs. So potentially, like, they just really were comfortable playing against this strategy, and now they're shifting into, like, the puppy drafts and newer drafts. The lack of TI experience might be hindering them a little bit. There's also just being under the microscope, right? Like, teams are identifying what works for Thunder Awaken, and they're banning that out. And what works for them? Tiny, Dawnbreaker. Every single game, you're going to see them ban. Tiny is a must ban, yeah. And Dawnbreaker, I mean, I feel like we mentioned Sacred with the Tidehunter. If you put a Dawnbreaker in that game, the script is going to be completely different. The game is going to be much easier for them to play, like keeping that spark alive. But your main point was don't pick SF, right? If you're Liquid, yeah, you just stay away from SF, stay away from and you're fine. Yeah, they are way Makes too sense. understanding of how to play against this hero. I feel like Liquid bans are always really funny to watch because the second phase is just, it's always their comfort. It's not what's good or bad for this game. It's get rid of that Pudge, the Lone Druid, you know, what have you. They have a very comfortable hero pool that always needs to be addressed. Now look at that man, the Lone Druid Slark player himself. Well, it looks like we're ready. They're ready. Let's get into the draft. Liquid versus Thunder Awaken. Team Liquid versus Thunder Awaken. Game 1. That gentleman says it way better than me. Yes, game 1, moving into the draft. And Liquid, as you mentioned, you know, haven't played a lot of SF recently in their matches versus OG today. We saw the Bloodseeker last pick for Matu. We've also seen more Drow Ranger as well, which Matu played, and that was you know, went 2-0 in those matchups. It was also almost the same lineup, by the way. The lineup that Liquid drafted, almost the same that Aster went with Drow, Lina, and Pango on the offlane. So they definitely have a good reading on the meta right now, Sheik, right? Yeah, everyone's abusing the meta. We got Leshrac out there as well that Liquid absolutely love playing. So I guess it all comes down to looking at these bans, what people are going to want. Like, does Primal get through? Man of the hour? I'm sorry, look at that man. I'm looking. Not only is he buff, but the suit as well. Yeah. I think the suit, the jacket is only there to cover up the biceps, right? Like, he's just... Is that why you never wear a suit? Yeah, I'm the opposite of that. He does it for game 1, they take it off for game 2. It's like, oh. I was just grabbing food and had to run over, but yeah, that's it. Oh, interesting bans though from Liquid. So they banned the Dawnbreaker, they banned the Nyx, but because their first pick, they're now offering up Thunder Awaken. Are you banning Tiny yourselves, or are we going to pick it up? Okay. Or they might even just be giving Thunder Awaken a Tiny. They're taking the Tiny away, I would right? assume so. Surely you do not give Thunder Awaken a Tiny in this best of 3 lower bracket. You know, it's been too instrumental in their success. I mean, there are other options for Boxy would be a Clockwork or a Tusk if they really like. There's also Undying in the pool that Insania has been playing very well this tournament. Whoa, where's that going? It's a Juggernaut cosplay, just quickly went for a spin. Yeah, there's a ton of heroes that are still very popular, that are left in the pool. So it's Tiny, it's Enigma, it's... I think we're getting in-game comms there for a moment. I wasn't sure. I thought I heard voice line. Is this new thing in the game, James? You know, I've never actually used a voice line. Really? And I still play Dota. And I don't know how. Yeah, so there's one from Seb. By Liz's voice line. I'm really grateful because what happened last year, right, with voice lines, the OG had a voice line with Seb about, I think you're wrong, I think you're really, really wrong. And during the draft, all you'd hear would be like, yes, I think they're going to first pick Tiny, like they could hear. And the player would spam it. And all we hear on the panel would just be Seb going, I think you're wrong, I think you're really, really wrong. And it still gives me PTSD to this day. But yeah, luckily in this time, we were correct, yeah. Did you ever play pubs with Seb? I've had a couple of times. 10 or 15. So we're playing into a Tiny right now, and I would like to see Thunder make sure that they have heroes that can deal with the repositioning of it, because whenever you don't have any sort of mobility or ways to itemize yourself to catch up with that, it kind of sucks. That's no repositioning. That's literally just being sent to the fountain every single time he jumps on you. Yeah, but you how many times have we seen teams this tournament? They just abuse this stupid toss. They throw someone back, and then instantly your whole team fight is just lost because you're one man down. Is it some CM Tusk? Some icy combo once again from Thunder Awaken? Maybe pretty banging.
Yeah. I wouldn't mind something aggressive. They just need to be thoughtful that there's that potential Enigma on 8 right now for Liquid. And this is just so the CM, like a million times you said it. It kind of just helps with these later picks in the draft of these physical damage offlaners and stuff that people are abusing. Crystal Nova so nice against it, and the Mars is this jump I wanted. If you get tossed back on someone, the Mars can follow that with a Blink Arena. And you get Lash, right, Tiga? Versus the Mars, there's always a good amount of damage. Yeah, this is the same style of draft that Thunder Awaken had against Entity when, you know, in that super long, actually it wasn't even a super long game, but it was a CM Mars and then Entity had, I think it was Leshrac plus Marcy or something, but in doing so, it was the same style of play where Mars, you kind of need you're really good at one big fight, but you're not good at cheap fights. And now this Leshrac, tank you really quickly, you can punish an arena, very cheap fights. Move to the next fight and go again. The nice thing though, at least, is your Mars should be coming online faster if he's going for a blink first than the Lesh. Like the Lesh finishes his Bloodstone around like 15 plus minutes, and Tiny, if it's a support, will also be getting that 18-minute-ish blink dagger. So there is a chance here for Thunder to beat that timing with their blink on Mars and just really go for these smokes. Yeah, but he can be, like Tigav said, the cheap hero as well, the cheap Lash. The cheap Lash? The discount Lash. That's nowhere as good as having a He just gets some levels and that's it. He runs you, he sits behind the trees, uses Diabolic Edict. But the Bloodstone is where he becomes unkillable. I love these bans though, because you're talking about this style of fighting and stuff, and you have Oracle, a silencer. These heroes, they enable this skirmishing style, just X10. Oracle gonna keep the Leshrac alive, silencer just covering from the team fight. So Thunder Awaken are respecting Liquid's playstyle, changing up the bans that they've done before against other teams, just because they know that they have lost with this opening before, because they can't match the early fight. They need items, they need a little bit more success in the lanes to get to that mid-game happiness. It's also Insania, right? Right. Oracle. Dude, I know Insania's the Oracle player, but when I saw that Oracle, the first thing that went into my mind was, oh yeah, Oracle ban, that makes sense. Tiger's been playing that a lot this tournament. Oh, my heart. Right through the field. It's too soon, right? It's too soon. It's been like 3 hours and you're bringing it up. Oh no. I have a little cry. Meanwhile, Liquid, they just ban out the Snap. They don't want that combo Snap plus Mars. Also, something that we didn't mention is that it is Thunder Awaken. We see this Mars. It can be mid as well. Snapfire as well, one of the most picked positions. Well, not one of the most picked position 4s in the area, but in the region, but a very popular one, right? It's one of the most flexed heroes in the region, for sure. Like multiple offlaners in SA play Snapfire in the offlane. I think even Sacred has played it offlane this TI. I'm very sad. I wish I wanted to see that again, but it's not. Oh, it's still got potential 2 more games. Yeah. Okay. Lone Druid banned out. Draft-wise, they've left Pudge in, which is something that they really enjoy playing. Yep, Pudge is really good here, just because you get tanky against the magic damage quite early on. Like Undying is still available for Insania if you want to do like a 1-2 pick, Undying plus a core, and then Thunder Awaken also needs to think about early game damage a little bit more. I feel like if you're Liquid, Undying is the only melee support that I can imagine Insania playing. He's most of the time, you know, that sneaky guy on the back lines. Some Lich, some Lich. Yeah, exactly. But Thunder Awaken right now, they need to potentially to pick up the position 4 here, but a lot of them are already been banned out. So many have been banned. Yeah. I know that Matthew likes playing as Hoodwink a lot. I mean, Matthew is a player that is really good at starting fights. Yeah. Oh my god, it's stylish. It's the Matthew Rubik. I mean, this is like what, his best hero or one of his favorite heroes? I mean, he's very comfortable on Rubik. And you have amazing steals this game. Yeah, I think it's the first Rubik of TI as well. I don't think we've even got to see it yet, so that's going to be a nice little show to put on. How do you feel about Disruptor? Disruptor? Yeah. I mean, I'm always versus the Mars as well. I'm chilling. Sounds Silence versus the Rubik. Liquid picked up the Disruptor from VP when they played against them in the qualifiers. They said that they really liked how they used it and they wanted, and then they just started playing it themselves. You saw Insania play it like 3 games in a row to great success. Blitz isn't laughing this time around in the draft. Previous drafts, he's been having a giggle. Dude, Matu's whole life is on the line. If they lose TI... Whole life? It's not that. They just hurry up, die. Professional life, yeah. He's dead to Sheepo if he retires. No. She takes her Dota very seriously. Very serious business here. They just replace you with a bear just like that. You never get seen again. But again, this also probably stops Liquid from thinking about Brood, right? Like with the Mars and the Rubik, that should be good enough.
Yeah, the CM as well is a very soft counter to Brood because if you see it, like right now, Liquid have to pick 2 heroes. You just pick up some Sven-esque carry, or even you can even do like a Gyro type thing, and then you just win the lane so hard, and then you rotate Mars in after that. You're actually pretty comfortable. But I think right now, Liquid are just deciding: do we want Insania to be on a meaty frontlining hero? Oh, okay. They get something against the Mars, right? Like Lifestealer probably. Nice. Together with the Pango, both heroes that deal with Mars extremely well. Like when Mars came into the meta, instant answers from the offlane came in the form of Pangolier and a couple of other heroes. Pango with his Rolling Thunder, he can go straight through the arena, always is able to fight. It ruins skirmishing lineups. It's very strong. It enables it immensely. So a quick defusal and go. And the Basher as well. Yeah, like picking Enigma into this, like sure, Enigma will do great against Lifestealer throughout the game, but Liquid's already got a soft cover with that Pangolier behind the Basher. In the previous game, they banned it out when they picked the Enigma, sorry. But the reason they are picking it is for the lane, I would assume. Lifestealer is going to struggle really, really hard to contest CS against all these Eidolons. So alongside laning with, I'm assuming, Rubik, you're doing a lot of damage reduction. You should absolutely annihilate this lane. I'm a little bit afraid for Thunder Awaken in regards to, sure, Enigma can deal with Lifestealer, but what is their way of repelling Liquid from invading their jungle, from contesting stacks and fighting? Like, if Arena's not up, sure, you've got some small spells from Rubik and CM, but there could be a little bit of disparity on how aggressive teams can be. Those small spells that you're mentioning need to be really big, from Rubik at least. Like, he needs to find some good steals and utilize them in that mid game, because I'm looking at Mars, I'm looking at Enigma, I'm not seeing a ton of damage coming from, a ton of skirmishing power coming from Thunder Awaken, and the heroes that are up against them do not care about the arena. You have Pango, you have Lifestealer with Rage, and you have Lash that's able to dish out damage through it, so the setup from Team Liquid looks really solid versus the Mars. I actually like their skirmishing. I don't like their massive team fight. Like, if everyone brings a 5v5, then I think the problems you guys talk about are like valid. But if you're able to just sustain yourselves long enough, you know, for Rage to run out, or you're smoking and making these small moves, I definitely think they have really good early game spells to do that. And I think another thing that's really nice to consider is because Rubik is a threat in the game for Pango, he has to use his shield crash at the very beginning of his role, which doesn't necessarily mean he's going to get that damage onto heroes. So he might just level up way more his swashbuckle and focus on that damage, and then you don't get the crash damage in the role. The question for Liquid right now is: are they putting their Leshrac into the offlane like Secret demonstrated yesterday, or are they Pango going mid? I guess the main thing here is it's Insania has the last pick right now in the draft. Sometimes Liquid they get to the very end, it's like, oh, Insania, still got to pick a hero here, boss. But it seems like, you know, obviously we're waiting on Pakaz's carry hero. Are we kind of thinking like something like Slark, and then you can play something melee, or is that a little bit too dangerous for them? Because of the Leshrac, it does put a little bit of a sour into it, but into everything else, there's some AoE from him, from Pango as well. Yeah, exactly. But it is possible. Like James, so far you've been on 100%. I'm going to say it's TD or Slark. There you go. I think something like a Terrorblade would fare nicer for them, just because they have so much team fight that if they just pick a hero that can push out waves, prolong the game, and then they get their items, the BKB on Enigma, they have a free game. And Lash isn't really a counter, right? To the TB. You should be completely fine in that matchup. Yeah, not so much. I'm just thinking about, I like the Terrorblade, I like the Faceless Void, I think the idea about pushing waves is pretty lovely, but as well, I just want to see something that scales into the late game. You really like those big circles, the Chronos, you want the Black Holes, the Mars Arenas. Could just be like a Bloodseeker, right? CM Bloodseeker lane, go, oh, there we go. Nice one. Sorry, I just thought it got banned, because why wouldn't it? Into two teams that love Bloodseeker. Ooh. But yeah, it's now just a strong lane. It also has the wave clear, obviously Bloodseeker into Pango. It forces Leshrac to stand still in the early aggression. Like, they needed something to just prevent Liquid being confident in these earlier like jungle invasions. And Bloodseeker, he can poke his head over, take a spell, take a rupture, and we'll go back to farming, boys, until we're really strong. I've seen him go mid at like 8 minutes. Please, I want to see it. Thank you very much, guys. We're getting ready. We're going to go over for a pre-game interview with Slacks, who's with Blitz. Absolutely. We are here yet again with Blitz. I'm sure you are getting very used to this, but should everything go according to plan, you won't see me again. Now, last time we saw Matoma Man be put onto that Bloodseeker, he did exceptionally well, but I feel like he kind of stole that strat from another team. Now they have it. Pakaz Bloodseeker. Pretty terrifying stuff. Are you ready? I have no idea. He's a really good player. Like, everybody at this level
at this point is just top of the top. So I'm sure it's going to be a struggle, but I'm sure my team can also end up on top. I see most of your time in the drafting with Matumba Man kind of by his side, a very stoic and stone-faced stuff. Is he doing most of the talking? Is it just between you two, or is Insania still doing a lot of feedback on this? Aiden gives us a ton of feedback. Most of the time, we kind of ask for a little bit of silence so we have some time to think, but yeah, I mean, doing it with Matu is a dream. He's one of my best friends, and being able to be on this stage in front of all these people, working together, just like a dream come true. Oh, wow, fantastic. You know what my dream is? Watching this game, my friends. Let's get into game one right now between Thunder and Liquid and throw it to the caster. Well, we heard about Team Liquid, but what about South America? No SA team is placed higher than top 6 at a Valve Major or TI, and Thunder Awaken is looking to change that. But they're probably experiencing a little bit of deja vu, Avery, because Stockholm Major, they themselves set the record at top 6 at a Valve Major by being able to get to the upper bracket semifinal, where they unfortunately ran into Tundra and got 2-0'd. Then they get knocked down to lower bracket, run into OG, another Western European team, and get 2-0'd. Now, here at TI, they get to the upper bracket semifinal. Who do they run into? Team Secret, another Western European team. They get 2-0'd. Now they're in the lower bracket. Now is the chance. Now is your time. 30 seconds to battle. Alrighty, I thought Fixie you are going to start, but alrighty. We are back. This is the 4th BO3 of main event day 4. मेरा नाम है मनीष कराट कारकी और मेरे साथ है अमृत गौरव एक ये फिक्सेस कास्ट इंस्टाग्राम पे और ये भुवनेश्वर के क्यूटी हैं और हमारे जीसस के खास सुपर जॉन @I सुपर जॉनी हम तीनों मिलकर आपके लेकर आएंगे बेहतरीन डोटा कास्ट और थोड़ा सा फन डालेंगे बीच में बिकॉज हम तीनों बहुत ज्यादा डायनामिक पर्सनालिटी वाले लोग हैं और आपने शुरुआत से ही मतलब मामला बिगाड़ दिया। ऑलराइटी खराब था मेरा। हाँ बहुत ही। I want you to go for a fresh start. It was like alrighty. वो टी नहीं लगता, वो डी लग जाता है। अच्छा alrighty. फिर से टी। Alrighty. Alrighty. Well, टी होता है alrighty में डी कहाँ से लगा है? वो मतलब वो थोड़ा सा ना बेंड होता है। जॉनी आप बताइए। नहीं जॉनी करेंगे देखिए। Alrighty ladies and gentlemen. दे अभी एम्फेसिस डाल दिए। एम्फेसिस डाला है इसने मतलब जानबूझ के he is not natural. I think ये दोनों बिके हुए हैं। ये सारे दिल्ली वाले बिके हुए हैं। नहीं आप नहीं बिके। ये क्या ये जो Yes. No, I don't. नहीं. Don't you dare to touch fixes. देखो Fixes comes from a very sophisticated background. नहीं कुछ sheltered welter नहीं है। एक इंसान अगर ये बोलता है कि why can't you buy a car fix? Because garage में garage में parking space नहीं है। क्योंकि छोटा गराज है। ये भी तो हो सकता है। गराज है बड़ी बात होती है। दिल्ली में नहीं गराज की जगह अरे ये दिल्ली है ना, हम भुवनेश्वर में रहते हैं। भुवनेश्वर में बहुत जगह होती है। आओ आपको जमीन दिलाता हूँ। 2 साल से तो आप भी आए, अब आप गुड़गांव से हैं। बट चलिए इस गेम की तरफ आ चुके हैं। एक बहुत ही सुंदर गेम, टीम लिक्विड वर्सेस थंडर अवेकनिंग। एंड कल हमने मैथ्यू के तरफ से काफ़ी अच्छे चीज़ें देखी थी। आज कुछ अलग देखना ज़रूर चाहेंगे, बट फिलहाल के लिए मीके एज यूजुअल अपने लेन पे काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। एक बार ये ड्राफ्ट पे अगर नज़र डालें तो वी गॉट सम इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग ओवर हियर। A lot of infestation combinations I can see. You know, Pango going in, साथ में Lifestealer चले जा सकते हैं। Tiny के अंदर भी जाके when he initiates with his avalanche and toss, he can also come out. Lane presence काफ़ी अच्छी, late game भी काफ़ी अच्छी team Liquid की। But when we look at a lineup of Thunder Awakening, I love this Rubik. I think Rubik main stage पे हम पहली बार देख रहे हैं। It's gonna be fun to watch that. काफ़ी सारे अच्छे spells हैं जो यहाँ पे वो चुरा सकते हैं। And Rubik is one of the most complicated support heroes you have to play. बहुत ज़्यादा ना आपकी positioning पे बात आती है, बहुत ज़्यादा आपके spell stealing, आप किस time पे कौन सा spell steal कर रहे हो उस पे बात आती है। दुनिया में ऐसे बहुत कम players हैं मेरे अलावा जो अच्छा Rubik खेल सकते हैं। अच्छा और कौन सबसे अच्छा खेलता है? देखिए एक ज़माने पे फनिक थे,
उसके बाद हमने FY की बात करी। FY फेनिक्स से पुराना है। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ मतलब सेम जनरेशन के ऑलमोस्ट थे। फिक्सर्स ऐसी चीजें बोलते हैं ना, क्रैट सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कहीं वो तो गलत मैचेस नहीं देख रहे थे। इंटरनेशनल जिता दिया आपने, प्लान फ्लैग्स का लेट गेम चाइनीज से जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद अभी जो आपकी सुबह की लेटेस्ट आई है वो ये आई है कि आपने लिक्विड के बॉक्सी को जेरैक्स बोल दिया था। वहाँ पे तो मुझे लिटरली भाई जेरैक्स कैसे नहीं पता। आजकल मैं नेटफ्लिक्स पे गुड डॉक्टर देख रहा हूँ तो ना हर बीमारी या तो कार्डियक वगैरह, तो मुझे आ गया था कार्डिक अरेस्ट हो रहा था आपकी बात। अरे मैं हूं ना, कॉन्फिडेंस जो आपके चेहरे पे होता है ना कि झूठ बोलते हुए कि मैं तो यूरी गैगरिन हूँ, समझ रहे हो? वो वाला आपका कॉन्फिडेंस है। नहीं ये कौन था? अरे यूरी गैगरिन फर्स्ट मैन टू गो टू स्पेस। ओह मैन, फर्स्ट इंसान। पहला इंसान कौन था मून पे जाना है ना? मून पे स्पेस मतलब यूरी गैगरिन। अरे यार तुम मत बोलो। अरे वो स्पेस था। No, I think he is right. I think exactly. अरे I am right. सीन क्या होता है? I'll tell you the entire history. I'll tell you the. अरे भाई डोटा चल। If you want to talk to fixes, please ready with the facts. Else his confidence, being a lawyer, fake confidence दिखाना तो जरूरी है। अरे नहीं, I am 100% श्योर, क्योंकि वो एक जो टाइम चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, और वहाँ पे पहले इन्होंने डाल दिया था। Fixes is right. यूरी गैगरिन पहले कॉस्मोनॉट थे जो कि इनफैक्ट कोल्ड वॉर से पहले की बात है। कॉस्मोनॉट पता है तुझे क्या होता है? कॉस्मोनॉट आर बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स इक्विवेलेंट टू रशिया। रशियन पढ़ते वहां जाके? नहीं, रशियन एस्ट्रोनॉट्स आर नोन एज कॉस्मोनॉट्स। बट ये इसकी जो बैकलाइन स्टोरी ये है कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब यहाँ पे हमेशा हर चीज में नोक झोंक चलती रहती थी। जब रशिया ने पहले यूरी गैगरिन को भेज दिया, अमेरिका वांटेड टू कम बैक विद द काउंटर। वेट अ सेकंड, आपकी स्टोरी के चक्कर में 2 किल्स निकल गए हमारे। चलेगा, शांत हो जाइए, हो गया। यूरी गैगरिन हो गया, वरना मैं टाइनी बन के आपको स्पेस में भेज दूंगा। शांत हो जाइए। वही तो सपना है, आसमान में जाना है, नीचे नहीं आए। आप सोचिए, आप जो चीजें करते हैं वो सेम चीज अगर स्पेस पे आप कर पाए, ऊपर जाके डोटा खेले। नेट नहीं आएगा, पिंग ज्यादा आएगी। क्या पता डायरेक्ट सैटेलाइट पे कनेक्शन, मतलब पिंग ही नहीं। वो फिर स्टारलिंक लेना पड़ेगा, $100 का अलग से खर्चा है। चलेगा। 100 नहीं, एक्चुअली $1000 का खर्चा है। $40,000 तो आपके मतलब चेंज आप टिप देते हो वेटर्स को रेस्टोरेंट पे आज के रेट से सुना है। आपके अकाउंट है मेरे पास, उससे देता हूँ। $100 के आधे भी हो जाए कुछ तो। अरे ओ हेलो, काम डाउन, कम बैक। 4 किल्स हो गए फिक्सेस आपकी बातें झेलते हुए। देखिए अब मतलब 5वां होने जा रहा है। थंडर अवेकनिंग मार रही है टीम लिक्विड को दौड़ा के। क्यों ना मारे, रूबिक उछालेंगे, अरे बच गए, फिर अपने तरफ लाएंगे ब्लड सीकर का, तब तक वो गोला आ गया होगा। बहुत हो गया। ड्राफ्ट के बारे में बताइए। वही तो बोल रहा हूँ आपको। देखिए कितना इनिशिएशन, कितना एनेबलिंग है। स्लो भी कर सकते हो, बहुत चीजें कर सकते हो। देखो रूबिक बेसिकली हो क्या रहा है, रूबिक उछाल रहे हैं, फिर अपने तरफ ला रहे हैं, तब तक ये ब्लड राइट चल जा रहा है, वो साइलेंस हो जा रहा है, और उतने में डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। और एक बार आप सामने वाले प्लेयर्स को भी देखिए, अभी अर्ली गेम है तो ये ब्लड सीकर का काइंड ऑफ क्रेम डे ला क्रेम फेज है, क्योंकि लेट गेम तक अगर जाता है तो टीम लिक्विड पे तो अच्छा खासा गेम चलने वाला है। बट वी स्टिल हैव एन एनिग्मा, तो एनिग्मा के साथ काफ़ी सारे कॉम्बोज। अगेन टीम टंड्रा का जो टीम फाइट पोटेंशियल है मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट द बर्स्ट पोटेंशियल आउट ऑफ लिक्विड आई रियली लाइक इट। अभी हमें पता चला है, हमारे एक मित्र हैं जो डोटा के काफ़ी बड़े फ़ैन हैं, उन्होंने भी ट्यून इन किया हमारे ब्रॉडकास्ट पे। सो सागर, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। इनको ही हमने टस्क गिफ्ट किया था, वो पॉप फिगर आप ही के दोस्त हैं। एंड यस, मुझे भी याद है जॉनी के फ्रेंड है, नॉट द फीफा वाला सागर, दिस इज डिफरेंट। सो ही इज जॉनीज फ्रेंड एंड जॉनी वाज वेरी एक्साइटेड कि उनका बर्थडे आ रहा था, एंड जॉनी लिटरली वर्कड हार्ड टू गेट दैट प्लशी। बहुत ही रेयर, मतलब लोगों को बहुत मुश्किल से मिलता है प्लशी, स्पेशली इंडिया में। अगर आ जाओ, इंटरनेशनल के स्टेज से आया था। एग्जैक्टली, इंडिया में आ जाओ तो मतलब उसकी जो प्राइसेस होते हैं, मतलब कुछ भी बन जाते हैं। मतलब क्रैट होते तो उसके ग्राफिक्स कार्ड निकाल देते। क्रैट के पास 2 एजेस पड़ी हैं। अरे पैसों की कमी थोड़ी है क्रैट के पास। क्रैट तीसरी एजेस कब आ रही है? 3 टाइम TI विनर। नहीं, उस टाइम जिस दिन आएगी, जिस दिन मेरी कोई फेवरेट प्लेयर्स फिर से खेले। ओजी तीसरी बार जीती। उसके अंदर मेरे बॉयज होने चाहिए, सेब, नोटेल, टॉप बनाना, जेराक्स। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू जेराक्स, आफ्टर विनिंग द सेकंड इंटरनेशनल 2019 के बाद रिटायरमेंट, ही केम बैक इन EG, ही गॉट किक्ड आउट। मतलब इंटरनेशनल चैंपियन को किक कर दिया। बहुत सारे फैक्टर्स है, विल जस्ट टॉक अबाउट इट, क्योंकि यहाँ पे डार्क मागो ने अपना अरीना चला दिया था, बट नो आउटपुट कमिंग आउट।
और क्रिस्टल मेडिन को इनफैक्ट गवा दिया गया है इस सिचुएशन में। बट आई थिंक क्रैट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, लाइक देयर कुड बी मल्टीपल फैक्टर्स, क्योंकि आप जब टीआई जीत जाते हो, ये वन यू नो द हाईएस्ट, ये ना ये जो नॉर्मल क्रू साइड के डायलॉग्स है ना कि अगर हम टॉप पे पहुंच गए देन हाउ टू कीप दैट एटीट्यूड ऑन, आप फिर से आए हो फिर से जीत गए हो। और एक घोड़े की खासियत ये होती है कि वो हर बार रेस में पूरी जान से भागता है। और नहीं भागने तो मत भागो ना फिर। देखो ये ना मैं अपने जो आपस के संगी साथी हैं look at that उनके big साथ relate blunder. करूंगा, उसके बाद आऊंगा। बट फिलहाल के लिए टाइनी थोड़े आउट ऑफ पोजीशन पकड़े जाते हैं। 2 बार हुआ है, 2 बार वो टाइनी पकड़ा गया है। मैंने एक चीज भी देखी, आई थिंक छोटी मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाती है कि जब यू नो यू गेट टू दैट पॉइंट वेयर यू आर वन ऑफ द चैंपियंस, एंड कभी कभार वो ना वो एटीट्यूड में भी एक बदलाव आ जाता है, एंड समटाइम्स इट डजंट फेवर द टीम। एंड I'm not telling कि that would have been the case, but there is a small possibility. But फिलहाल मातू के ऊपर रप्चर का इस्तेमाल किया था यहाँ पे, but interestingly, you know, the lanes how they have formed it has been क्योंकि यहाँ पे Bloodseeker is playing on top, whereas they've given Enigma the bot to farm and just farming it against lifesteal. What's going on, Krat? मतलब क्यों ऐसा किया कि आपके कैरी को आप टॉप भेज चुके हो, एनिग्मा नीचे आराम से फार्म कर रहे हैं? Is it to just try to get his early initial blink dagger and then get into fights? No, एक सेकंड मैं देखना चाहूँगा कि ये भी हुआ क्या। इन्होंने संडर मारा बट स्वॉच बकल से उन्होंने escape कर लिया। अब ये भी मुझे कभी-कभी समझ नहीं आता। ओके, यहाँ पर हार्ड कैरी कौन है लिक्विड की तरफ से? दैट इज माटोमा मैन जो लाइफ स्टीलर खेल रहे हैं। और थंडर अवेकन की साइड से इसको बोलते हैं सर एग्रेसिव ट्राई लेन। इसमें आपके जो सपोर्ट्स हैं दे आर बेटर इन लेन प्रेजेंस का ज़्यादा बेटर है। सो आप क्या कर सकते हो, आप वो दो सपोर्ट मिलकर कैरी को हैरास करेंगे और आप देखो ना बॉटम लेन में एक प्लेयर होगा। और यहाँ पे सोलो ब्लैक होल चला दिया। मार्स आए तो ज़रूर थे बट यहाँ पे सीक्रेट इज ऑफलाइन, ज़ाय इज ऑफलाइन। सो ऑफलाइन आपस में लड़ रहे हैं और 3 प्लेयर ऊपर है, 3 प्लेयर ऊपर से आ रहे हैं। इंडिया की भी 2 विकेटें गिर गई हैं। सो इट्स नॉट गोइंग गुड। सो अभी देखिए, अभी देखो माटोमा मैन के साथ सपोर्ट में कौन कौन है। इट्स लिच एंड बॉक्सिंग जो कि टाइनी खेल रहे हैं। तो इट्स एग्रेसिव ट्रायल इन बोलते हैं। जैसे आप अपने 3 प्लेयर ले आए, वर्ल्ड फेव और पंक, मैं भूटानी और जॉनी को ले आया, ठीक है। वर्ल्ड फेव और पंक ज़्यादा इंक्लूड कर, मैं नहीं खेलता ज़्यादा नहीं करता। पिटने वाली साइड पे तभी अच्छा हाँ ठीक है ठीक है कि अब तेरे सपोर्ट्स मेरे सपोर्ट्स को मुझे हरास करेंगे, मैं पैसिव खेलूंगा, ठीक है। ये अप्रोच है और ये मेरा ऑप्शन नहीं है मेरे अगेंस्ट तुम्हारे अगेंस्ट जाने का। तुमने बनाया है, तुमने मुझे सरप्राइज किया है कि ये तो एग्रेसिव ट्राई लेना है इसलिए। एंड आई थिंक इसी के चलते थोड़ा बहुत अर्ली ऑन प्रेशर भी डाला है बट देयर यू गो। ब्लडसीकर को कोई खास तौर पर परेशानी नहीं, रप्चर भी डाला है ज़ाई के ऊपर और खुद को ही कुर्बान कर दिया वहाँ पे। भगवान जानता है कि ऐसा डिसीजन मेकिंग क्यों लिया है यहाँ पे ज़ाय भाई ने, बिकॉज लगातार पिछले 1 मिनट में 2 बार मर चुके हैं। थोड़ी देर पहले सीक्रेट के ब्लैक होल में मरे थे, अब फिर से रप्चर खाकर उन्होंने रोलिंग थंडर यूज किया एंड ही डिप्लीटेड हिज रिमेनिंग एचपी। गॉड रिब्यूक मारकर वो भी क्रीप कलेक्ट करने की कोशिश। अब देखिए लेन वापस स्विच हो गई, अब हमारा ऑफलाइन ऊपर आ चुका है। अब ऑफलाइन के बाद डिसेंट लेवल्स भी हैं, वो आइडलॉन्स यूज कर लेन के अंदर अच्छा खासा सर्वाइव कर पाएगा। और जो हमारे ब्लड सीकर हैं, ही वेंट बैक टू द सेफ लेन, ही विल स्टार्ट क्रेविंग फॉर द नॉर्मल आइटम्स और ऐसे ही गेम धीरे धीरे आगे। So I think you know थंडर अवेकनिंग की जो स्टार्ट हुई है वो काफ़ी बेहतरीन हुई है क्योंकि लुक एट द क्रीप स्टैकिंग ऑल्सो, अच्छे खासे स्टैक्स ले रखे हैं। एंड अब जैसे आपने कहा मार्स अपना गॉड रिब्यूक भी यूज़ करेंगे। देखिए एक चाटा पड़ता है, कितना लो एचपी, एक और स्पीयर एंड और एक गॉड्स रिब्यूक एंड दिस क्रीप वेव इज कम्प्लीटली देयर्स। बट उसके बावजूद भी आई थिंक मीके एक ऐसे मिड जो कि कभी बहुत रेयर ओकेजन्स पे कभी अपने मिड हारे हैं, हैज़ ऑलवेज मेड श्योर is on the top of the net worth and आज का दिन भी उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था टीम लिक्विड को ओजी को एक करारी मात देते हुए STI से। करारी का तो पता नहीं, करारी थी यार, एक्सट्रीम करारी। हाँ डीप फ्राई कहते हैं, शैलो फ्राई नहीं, डीप फ्राई करारी। ब्रेड पकोड़ा बना दिया, थोड़ा जला दिया। ये मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। वी थॉट दैट ओजी इज गोना फाइट बैक। ओजी ने किया भी था, लाइक देयर वर फ्यू मोमेंट्स बट मोर देन दैट दोज ड्राफ्ट्स यू नो अभी भी मुझे लाइक आई थिंक हजम नहीं हो रहा। एट सच अ रिस्की फेज दे वेंट फॉर देयर सेफ पिक्स एंड आई एम टेलिंग यू ब्रो, युरागी का थैंक यू फॉर सर्विसेज आने वाला है।
वो नहीं करेगा तो गोल्डी पे करवा ही देंगे ओजी वाले। क्या पता, दुनिया हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम चांद तक जा रहे हैं, अब ये भी शायद, बट फिलहाल यहाँ पे टीम लिक्विड के प्लेयर्स, इनफैक्ट बॉक्सी एवलांच चुरा दिया गया है। वेरी गुड फॉर्म ऑफ इनिशिएशन, 2 डिसेबल्स ऑलरेडी रूबिक के पास मौजूद, और यहाँ पे रोलिंग थंडर के साथ काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है इनटू द स्प्लिट अर्थ, एंड मार्स सेज गुड बाय। डार्क मागो को वापस फाउंटेन भेज दिया गया, एक री-इनिशिएशन का प्रयास, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओह ब्यूटीफुल ब्लैक होल कमिंग आउट ऑफ सीक्रेट साइट, बट उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं था। अब ऑन द रिट्रीट टीम थंडर अवेकनिंग, बट मैथ्यूज उनके मुंह के सामने टीपी करने की कोशिश, एंड उनको भी गेम से मार दिया गया है बाहर। और अब इस पॉइंट पे काफ़ी अच्छे ट्रेड्स आ रहे थे। ओनली हैप्पी थिंग अबाउट टीम थंडर अवेकनिंग इज दे एटलीस्ट गॉट मार्टूज किल, सो ये एक चीज़ के लिए काफ़ी खुश होंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्या लगता है? जिस तरीके से डार्क मार्गो ने इनिशिएशन दिखाया था, लेकिन वो वेरी डीप इन, उनको रिचुअल पड़ा, प्लस चेन फ्रॉस्ट अकेला उन्होंने सरवाइव किया, जो कि मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव चीज़ तो नहीं थी। उसके बाद आपका जब आपका मेन प्लेयर जो आपका इनिशिएटर है, अगर वो मर गए, इट्स बेटर, आप थोड़ा पैसिव खेल के आगे बढ़ सकते हैं। बट गॉड नोज क्या दिमाग में चल रहा था इनके, उन्होंने ऐसा स्टेप लिया। बट इट्स ओके, अभी भी जो सिचुएशन अंडर कंट्रोल, 2000 की नेटवर्थ एडवांटेज है। और अगर विजन की बात करेंगे तो डायर साइड पे कोई भी रेडियन इन्वेजन नहीं, और सेम रेडियन साइड में डायर का कोई इन्वेजन नहीं है। और स्मोक करके हमारे 2 जवान फ्रॉम द थंडर अवेकन, रूबिक एंड मार्स आर ऑल सेट, बट वहीं पे लिक्विड के भी 3 प्लेयर्स ने स्मोक कर रखा है, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द अपर जंगल बिकॉज ये टियर 1 के आसपास है, एंड दे वांट हंट डाउन एनिग्मा। एनिग्मा को एक अंदेशा हुआ है कि क्या सीन है, बट मे बी अगर ब्लिंक वगैरह होता तो शायद बात थी। उन्होंने स्वॉश बकल मिस कर दिया, इसका मतलब जो उनका अटेम्प्ट था यहाँ पे गैंग करने का, ही गॉट फेल। इसका काउंटर पता क्या हो सकता था, यहाँ पर जो टाइनी है वो टॉस कर देता स्वॉश बकल पैंगो को एनिग्मा पे, उसके बाद सील क्रैश भी लगता, स्वॉश बकल भी लगता, और एक थोड़ी देर से एनिग्मा को होल्ड बैक कर पाते। बट यू नो इट वाज इम्पल्सिव, दे वांटेड टू गो फॉर इट, दे स्कूड अप, बट इट्स ओके। एंड ऑफ द डे दोनों की जान बच गई, कोई नुकसान नहीं, बट हाँ स्मोक की बर्बादी जरूर हुई है। बर्बादी तो हुई ज़रूर है यहाँ पे 10-6 का स्कोर लाइन, बट आई थिंक टीम लिक्विड जो धीरे धीरे वो नेटवर्क की लीड आगे बढ़ते जा रही थी, वो थोड़ा सा रिटेन किया है फिलहाल के लिए। यहाँ पे ब्लड सीकर कोशिश करेंगे सारे एंशिएंट्स यहाँ पे फार्म कर लें, और उनका जो अगला आइटम होने वाला है वो मशहूर बीकेबी मेटा आया गया, इतने चीज़ें बने, बट कभी भी ये आइटम तो नहीं जाएगा। इट इज़ वन ऑफ लाइक द क्विंटेसेंशियल आइटम्स। अभी तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है यहाँ पे थंडर अवेकन के लिए कि जो एडवांटेज इन्होंने अच्छा खासा अपने लिए बनाया था, जैसा फिक्सिस ने बोला, उसको स्लो डाउन किया गया टीम लिक्विड के द्वारा। दे रिवर्स दैट। अब वक्त है थोड़ा और प्रेशर डालने का, जैसा क्रैट हमेशा कहते हैं, कोट करते हैं सूच को, हार्वी स्पेक्टर को, प्रेस अंटिल इट हर्ट्स। एंड वेल अभी तो टीम लिक्विड काफ़ी ज़ोर की प्रेस कर रही है, बिकॉज सीएम को घूमते फिरते रास्ते में से गायब कर दिया गया। क्रैट, आप सूट्स के इतने बड़े दीवाने हो, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको वकील बनना चाहिए? आपको देख के मूड खराब हो जाता है। मैं तो डॉक्टर भी जाना हूं, इसका मतलब थोड़ा मैं क्लासमेट के साथ न्यूरो सर्जन बन जाऊंगा। क्या पता, कोशिश मैंने शर्लॉक होम्स देखना पसंद करा, मैंने वैम्पायर डायरी निकाल के घूमूं क्या दांत में, मारूं लोगों को कटियां। इट्स ऑल अबाउट द केस, इफ यू फाइंड इट। मेरे पास परफेक्ट आंसर था, बट आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ क्रैट एज अ कैरेक्टर इन वैम्पायर डायरीज। आई कैन प्ले अ गुड यू नो। क्रैट दो भाई हैं दोनों, नहीं डेमन और एफसी हैं दोनों के लिए यू नीड टू लाइक बिकम मिस्टर भूटानी फर्स्ट। अरे वो राह पे चल रहे हैं, मास्टर जेरार्ड। अरे चलेगा, क्रैट के लिए एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्या दिक्कत है, एक नया सीजन आ जाएगा। क्रैट एंड वैम्पायर डायरीज, सोचो कूल, द मेन ओरिजिनल वन। डेमन और क्लाउस घूम रहे हैं वहां पे, क्रैट जा रहे हैं। मैंने क्लाउस भर देना। यही तो जिंदगी का मजा है। खून चूसने की बात करें तो फिलहाल तो टीम लिक्विड काफी ज्यादा खून चूस चुकी है। लिच के पास खून है क्या, मतलब किसके पास? लिच के पास खून, मतलब खून, ब्लड। आई डोंट थिंक लिच के पास होगा। क्या होगा? खून। फिर क्या होगा? क्या बकवास। अच्छा मतलब ही इज अनडेड। अच्छा ही इज डेड। अरे ही इज, अरे सीन का वाइट रेड ब्लड सेल्स, ही इज बेसिकली ही इज अ वाइट वॉकर। तो ब्लड सीकर तो ब्लड बैंक है।
हाँ ऑफ कोर्स, गरम खून भाई, ब्लड सीकर, हस्कर, मार्स सब आसपास के हैं। ठीक है। I don't understand man. अगर ड्राफ्ट किया उन्होंने अर्ली गेम का, ब्लड सीकर है, they're not going for the ganks, they're just avoiding and they're just farming. अब उनके पास मेलस्टॉर्म है, अगला आइटम बीकेबी का वेट कर रहे हैं जानू। बीकेबी के बाद आई थिंक दे आर गोना स्टार्ट एंगेजिंग। मैथ्यू यही है ना, ठीक है। ओके। As अभी long जीते के चांसेस है ना, अभी जी। ऐसा लगा नहीं है। बीकेबी द मोमेंट उनको लगेगा कि गेम गया तो पहुंच जाएंगे वहीं पे। लास्ट टाइम भी अर्ली गेम अच्छा गया था इनका। नहीं, आई थिंक इनको अगले 15 मिनट के अंदर मैच में एटलीस्ट 7-8 हज़ार की नेटवर्क लीड चाहिए, क्योंकि अगर माटू वो फार्म पकड़ लिए तो मुश्किल हो जाएगा। आप टीम लिक्विड के लेट गेम की तरफ एक बार नजर डालिए, यू स्टिल हैव दैट लाइफ स्टीलर yeah, if he survives, and then even the Pangolier, if he can just do something. But I think अब थोड़ी देर में since BKB आ गया है, their next eyes will be on trying to take that Roche fight. Already initiation कर दिया, but सही टाइम पे blink out कर चुके हैं, and यहाँ पे ये अरीना हो चुका है फेल। और माटू ने कोशिश किया था कि आके CM के ऊपर चढ़ जाए। कितना बेहतरीन ब्लैक होल, देखिए कितने प्लेयर्स पकड़े गए हैं सेक्रेड के द्वारा, एक सेक्रेड प्ले, और 3 प्लेयर्स खत्म हो चुके हैं, ये चौथा होने वाला है। एंड जाय तो मुझे बचते हुए इस जन्म में नहीं दिखेंगे, साथ ही साथ सूली पे चढ़ जाएंगे हमारे प्यारे माटू। और इसी के साथ टीम थंडर अवेकनिंग ने जीत लिया है और ले लिया है इस गेम का पहला टीम वाइप without dropping a single player, and all thanks to that beautiful काला कुआं। What? The literal translation would be something else, इसलिए कहते हैं काला खाई। सोच समझ के बोलिए। बट मैं काला कुआं इसीलिए बोल रहा हूँ, तो खाई से तो थोड़ा नाम है इसका। इंग्लिश में बोल दो। मैंने क्यों बोला? कुआं एक बार अंदर गिरते हो और बाहर नहीं आ सकते। इसमें आ सकते हैं, लोग आते हैं। अरे उसके लिए आप जैसी मतलब ट्राई टू ओवर स्मार्ट, ठीक है। अरे रिप्ले देख। अरे क्या रिप्ले देखना, उन्होंने जो इसमें डाल दिया मिडनाइट। क्रिस्टल मेडन नहीं मार सकती गैंग में। अब क्या बोल सकते हैं इसमें? क्रिस्टल मेडन लिटरली AFK खड़ी थी अपनी अल्टी में, और उसके बाद भी माटू देखते रह गए। पीछे से बकायदा रोलिंग थंडर आया, उन्होंने CM की अल्टी कैंसिल करी, स्टिल CM सर्वाइव। इट्स अ वेरी बिग थिंग। परमवीर चक्र मिलना चाहिए। देखिए जो मैंने बोला था, मैंने देखिए कितने रीड्स अच्छे हो रहे हैं विदाउट एनी हेल्प, एनी सपोर्ट। मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। वो देखो बाइक आई और यहाँ पे एक को पकड़ भी लिया, उसको बाहर भी भेज दिया। डिड यू नोटिस थंडर के पास बाइक कैसे है? थंडर के पास ये जो बाइक चल रही है किसकी बाइक है? तो जाई की बाइक है। उससे पहले चुराया है यार। थैंक गॉड। अरे F5 के दीवाने हैं मतलब। और नहीं तो क्या, रूबिक लोगों ने मतलब कितना मेरा, आप जाके विन रेशियो देखिए रूबिक पे। आप मेरा डोटा आईडी तो बिल्कुल शर्म नहीं आती, पता नहीं। आप लोग बड़ा भाई है क्या मेरे से? हाँ। उसने आप कभी भी ऐसे बेल्ट टू वेट से मारा है ऐसे गुस्से में आके? 5 साल बड़े हैं मेरे से, और बहुत अच्छे इंसान है वो, मैं उनकी इज्जत बहुत करता हूँ। अगर मतलब ऐसा छोटा भाई अनोइंग हो और हाथ नहीं उठाया, मजाक की बात नहीं। हम वो सब हमारे यहाँ हम सब सुख चैन शांति में जीना पसंद करते हैं। तो भाई ये तो नहीं, आई कैन बिलीव इट। और वेरी वेल मैनर्ड सेल्टेड किड की बात नहीं, इधर वहाँ पे वैसे ही चलता है सब कुछ। ये नहीं चलते, हाथ पैर नहीं चलते, मतलब शांति से रहो। दही बड़ा आलूदम खाओ। इसलिए NCR बदनाम है पता है हर जगह। मुझे लगता है मतलब ये सब खत्म होने के बाद ना, मुझे क्रैट को अलग से एक इंडिया का भ्रमण में लेके जाना चाहिए। हाँ। क्योंकि क्रैट बहुत कम निकलते हैं। टूर ऑफ द कंट्री, होल प्लेस, कश्मीर से कन्याकुमारी। नहीं, आप निकलते हो यही आसपास नॉर्थ पे, कभी साउथ घूमिए, कभी वेस्ट चाहिए, कभी ईस्ट चाहिए, कभी नॉर्थ ईस्ट चाहिए, मतलब फिर दुनिया के बाहर जो दूसरे कंट्रीज, मतलब कितने पर्सपेक्टिव मिलेंगे ज़िंदगी के, अलग अलग लोग, उनसे घुलना मिलना अच्छा लगता है। क्रैट हमें करना चाहिए। पोलैंड चलते हैं, नोटेल से मिलकर आते हैं। चलिए पोलैंड भी जा सकते हैं, मतलब मेरे को भी आजकल बहुत ज़्यादा मन कर रहा है थोड़ा सा उस तरफ जाऊँ, नॉर्दर्न लाइट्स देखूँ, क्योंकि नॉर्दर्न लाइट्स का सही समय आ चुका है। और मेरा एक्चुअली प्लान भी था उसके लिए तो आपको आई हैव टू गो टू नॉर्वे, ग्रीनलैंड, उधर सब जाना पड़ेगा। स्वीडन, ग्रीनलैंड इज ग्रेट प्लेस। जी हाँ, आई मीन इट्स नॉट ग्रीन, इट्स बर्फ में डूबा हुआ पूरा। ग्रीनलैंड और आइसलैंड, दे आर लाइक काइंड ऑफ आयरनीज, या
तो एंड बट वहाँ पे लाइक नॉर्दर्न लाइट्स एक तो सपना है कि वहाँ जाना है, बट उसके लिए आपको चाहिए रहेगा 3-4 महीने से पहले से। हम लोग गलत हैं, इट्स नॉट इन पोलैंड, इट्स इन पोर्चुगल। ठीक है, पोर्टुगल सब अरे सब पड़ोसी देश हैं यहाँ पे, मतलब इट्स लाइक जैसे आप दिल्ली से जा रहे हो उड़ीसा, उतना ही दूर रहता है, तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे क्रैट बहुत बड़े फैन, यहाँ पे हमारे बॉलीवुड के जगत के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का, एंड इंस्पायर्ड है, मतलब ही वाज लुकिंग आउट फॉर अ रोल एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर कोई मूवी आती है, इज जस्ट अ टैलेंट टू बी डिस्कवर्ड। आई मीन हमने अभी एक स्क्रिप्ट तो बनाई, स्क्रिप्ट नहीं वो स्क्रीन प्ले लिखना बाकी है। मतलब कुणाल दा अगर मूवी बनाएंगे, डायरीज का एक इंडियन ये रीमेक भी नहीं। What happened to Kundu? देखिए Kundu called you. Yeah. We'll talk about it later. Why are you talking about it on air? I forgot. Even I got also. Did you forget हम live हैं अभी? क्या आप ये भी भूल गए थे क्रैश? Kundu is a stage host for Yeah. So, but calls थोड़ी private होती है ना? We won't talk about our conversation. कि हमने डोटा के क्या प्लान्स कर रखे हैं, because इंडिया में भी डोटा का बढ़ाने का जो जिम्मा है, हम अरे रुकिए, ब्लैक होल देखिए, सेक्रेट ने इस बार पकड़ लिया है लेशरैक को, और लेशरैक ने उसके ठीक बाद चला दी अपनी बीकेबी और पल्स नोवा के साथ। सेक्रेट को काफी ज्यादा डैमेज भी दे रहे हैं, पकास भी यहाँ पे फंस चुके हैं, और नो इट्स नॉट पकास, इट्स द रूबिक, एंड दिस इज लुकिंग रियली ऑफुल फॉर टीम थंडर अवेकनिंग। यहाँ पे पकास का अभी भी एजेस है जरूर, एंड यहाँ पे पासा पलट गया एक रैट। कितने लोग थे ब्लैक होल में? एक। तो आप इतना एक्साइट क्यों हैं? क्योंकि वो ब्लैक होल था। मैं पूछने वाला था ये, मतलब व्हाट्स द पॉइंट? मैं टाइम से दवाई खा रहा था। इट्स जस्ट वन गाय। मैं तो कह रहा हूँ जॉनी। अरे ऐसे क्यों चल रहे हैं? वो टॉन्ट है उसका। अच्छा जॉनी, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम जैसे नवंबर स्टार्ट होता है, आई वांट यू टू डिपॉजिट मेक अ सेविंग्स अकाउंट। हम उस अकाउंट में 1000 रुपये डालेंगे हर महीने। वी टेक फ्रॉम शर्मा, वी टेक फ्रॉम मिस्टर होगा, सो दैट मुझे पैसे ज़्यादा हो जाए, इलाज कराए। देखिए कितना बढ़िया खेला, बढ़िया खेला। इनको एक ही इंसान सुधार सकते हैं, हमारे अंशदाई एक अलग एजेस पुल हो गया है, और वो खत्म भी हो गया है। पैंगो गो बैक। अच्छा चलो जोन के लिए, सॉरी लेट्स सी करिए पैंगो तो सामने वाली टीम में, अब मेरा लेफ्ट। ओह ये तो बढ़िया स्पीयर था, 2 प्लेयर्स को ले लिया दीवार पे। हाँ ये बढ़िया था, मतलब चलिए डार्क मागो फाइनली कुछ तो अच्छा यहाँ पे इन्होंने बढ़िया खेला। अच्छा बट ऑल ऑफ अ सडन क्रैक टीम लिक्विड की साइड से काफी ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, व्हाट्स दैट अबाउट? बिकॉज अब धीरे-धीरे गेम थोड़ा लेट गेम में जाएगा, बिकॉज 28 मिनट हो चुका है, 25-28 मिनट, और ब्लड सीकर वर्सेस शैडो लाइफ स्टीलर के अंदर इफ यू कंपेयर इन द 1v1 बैटल, लाइफ स्टीलर कैन कट ब्लड सीकर इनटू 2, तो वही होगा, धीरे-धीरे चीज़ें बेटर होंगी। और जैसे जैसे टावर ले रहे हैं, नेटवर्क भी देखिए कितनी फर्क में आ गई है, और अब लाइफ स्टीलर भी क्लाइम करेंगे, अभी भी नेटवर्क के अंदर 3000 का फर्क है, 3000 मतलब एक शैडो ब्लेड का फर्क। तो इट ऑल डिपेंड्स कि अब कैसे क्या होगा, मतलब कि घर पर ये तो कुछ और है, मतलब डिपेंड्स कि इनिशिएशन कौन कैसे करता है बस। सो घूम फिर के बाद अब टीम फाइट्स पे आ रही है दोबारा से। नहीं आई थिंक अब ये पॉइंट पे हम आ चुके हैं वेयर टीम लिक्विड विल स्टार्ट विनिंग द टीम फाइट्स, क्योंकि अब बीकेबीज भी ऑनलाइन हो चुके हैं, अब कोर्स को अपने प्राइमरी आइटम्स भी मिल चुके हैं। लेशरैक इज पिकिंग अप ऑन फार्म, अगले 5-10 मिनट में द नेक्स्ट टारगेट इज टू पिक अप अनदर टीम फाइट, और उसके बाद रोश के लिए कंटेस्ट करे। अगर वो रोश भी यहाँ पे थंडर अवेकनिंग ले लेती है, तब आप बोल सकते हो कि येस दे आर स्टिल इन दैट जोन। बट अभी देखिए जो लीड काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, वो वापस से 3000 तक आ चुकी है। बट यहाँ पे अगर पकास का फ्री में बीके भी आप बेट करवा रहे हो, ड्यूरेशंस कम करवा रहे हो, तो यू नो लेट गेम में उनको कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आई थिंक मैं जब डोटा खेलता था, एक टाइम था जब अगर आपकी बीकेबी ड्यूरेशंस कम हो रही हैं, आप अगर रेसिपी खरीद लेते हो, तो आई थिंक वापस से रीसेट हो जाता था। लाइक दिस इज लाइक लॉन्ग बैक, राइट? तो रिमेंबर ये बीकेबी का हाँ। ये डोटा 2 में ऐसा कभी कभी नहीं है, डोटा 1 में होता होगा। नहीं डोटा 2 में भी था, वो ड्रम्स ऑफ एंड्योरेंस का होता था। आई थिंक बीके नहीं, नया बीके भी बना लेते थे। हाँ बीकेबी नहीं पहला होता था कि आप अब ऐसा सीन, पहले मेरे ख्याल से नया बीकेबी बनाने का ऑप्शन होता था, अब हाँ। तो ऐसे क्या बेचोगे तो वहीं से चालू होता था। हाँ वहीं से चालू होता था, तो पहले रीसेट कर लेते थे, लाइक लेट गेम में वापस से वो फुल स्लॉट होने के बाद यू गेट दोस बीकेबीज।
फिर से हमने देखा है लाइक जब क्योंकि तब एक टाइम होता था जब बहुत सारे लॉन्ग गेम्स देखने को हम लोग को मिलते थे, बट आज फिर एक ज़माना आया. आई थिंक TI4 वाज ऑल अबाउट स्प्लिट पुशेस एंड यू नो जस्ट टावर डाइविंग. बहुत वो NP वाला ज़माना था, मुझे इतना याद है. ज़्यादा पीछे नहीं चले. रेजर, ब्रूम मास्टर, स्कारलेट मेज, क्लॉकवर्क, वेनोमैंसर, ये चले थे. खाली टावर चल रहा था, मतलब 20-25 मिनट में गेम खत्म हो रहे थे. 12-15 मिनट में चालू कर देते थे. इट वाज लाइक कि टीम जल्दी से बेसिक आइटम्स कलेक्ट करो, यूनाइट करो एंड जस्ट पुश करो. और न्यू मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल सबसे वाहियात और सबसे बोरिंग इंटरनेशनल 2014 का था, जहां पर न्यूबी ने बीची को हराकर यू नो इंटरनेशनल जीता था. एंड आई थिंक इट वाज फिर उसके बाद आई थिंक शावेट ने शादी भी करी थी. हाँ. एंड ओ बेचारे रूबिक का पकड़े गए और उनके साथ चल रहे हैं. देखिए टाइनी के लाइफ स्टीलर, अगर वो कॉम्बिनेशन कॉम्बो एग्जीक्यूट होता है फिर आपको ही पता है क्या होगा, कौन निकलेगा उनके अंदर से. और निकला भी एक, चोट लगाई, बट इस बार का ब्लैक होल बढ़िया एग्जीक्यूशन होता हुआ और 3 प्लेयर्स यहाँ पे पकड़े गए. चौथा भी यहाँ पे फिनिश हो जाएगा. सेक्रेड एक अलग ही मुकाम पे अपनी गेम प्ले को ला के रख चुके हैं. हार के कगार पे चल रहे थे यहाँ पे. थंडर अवेकनिंग की वो शुरुआत हो ही रही थी कि टीम लिक्विड ने एक गलत फाइट फोर्स किया और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा. अकेले यहाँ पे मीके प्यारे बचे तो हैं, बट अभी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके बाद जो नज़र रहेगा वो होगा आपके रोशान के ऊपर. और ये देखिए कैसे खींचते चले आए और सारे प्लेयर्स भी देखे. ओ बीके भी लग गया, इतने बढ़िया बीके भी. चलिए फ़ायदा उठाते, क्योंकि जॉनी मिडनाइट पल्स के अंदर अगर आप बीके भी चला रहे हो, वैसे मतलब बीके भी बोल रहा हूँ, आपका ब्लैक होल चला रहे हो, ब्लैक होल का भी परसेंटेज वाइज डैमेज रहता है. जितने करीब उतना एक्स्ट्रा डैमेज रहता है. और मिडनाइट पल्स के साथ तो आप मेल्ट कर जाओगे. स्पेशली जो लाइनअप यहाँ पे टीम लिक्विड की है, गेम जितना भी लेट जाए, वो टाइनी अगर वो लाइफ स्टीलर दे आर कॉट, दे आर गोइंग टू मेल्ट लाइक बटर. इन बात तो आपने बिल्कुल सही बोली. एंड अलॉन्ग विद दैट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ये कि ऐसी गलती दोबारा ना हो. एक रूबिक के पीछे इतना सब कुछ खो दिया. रूबिक ने कितना अच्छा ड्रॉ करवाया, बढ़िया बेट कराया जी. और आई थिंक आफ्टर Zai's Enigma, I've been loving Sacred today. I think Sacred has been having better Enigma game. I mean the black holes, like the impact, the output that we are getting. And Mars का यहाँ पे रिफ्रेशर आ चुका है, लिच का यहाँ पे एथर लेंस आ चुका है. So we'll have to see कि इसका क्या फ़ायदा उठाते हैं. बट फिलहाल के लिए as things stand right now, Mike trying to dish some damage onto Pakas, परेशानी नहीं होगी. Lost him out and खुश है. देखिए जो चेहरे पे एक खुशी है कि सोलो यहाँ पे BS को पिक कर दिया. बट उस फाइट का वही कॉन्सोलेशन था, दैट्स इट. बट 24-14 का स्कोर लाइन और यहाँ पे इंतज़ार रहेगा अगले बड़े फाइट का. और इस समय आई थिंक टीम थंडर अवेकनिंग ने थोड़ा और टाइम बाय किया है. बट टीम लिक्विड अगर वॉट्स के ऊपर नज़र डालें जॉनी जी, तो थंडर अवेकनिंग ने अपनी अच्छी खासी वार्डिंग्स कर रखी. सो दे हैव विजन ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड एंड दिस इज़ समथिंग दैट दे आर डूइंग रियली गुड. एटलीस्ट दे आर काइंड ऑफ फोर्सिंग लिक्विड इनटू मेकिंग दोज मिस्टेक्स जी. एंड राइट नाउ आई मीन लेट गेम वी ऑल नो इट कम्स डाउन, पूरा बात घूम फिर के आ जाता है कि लाइफ स्टीलर कितने देर तक जिंदा रह पाते हैं एंड लेशरैक. वो दो अगर प्लेयर्स जिंदा रह जाते हैं, बीके भी एक बार थंडर अवेकनिंग के प्लेयर्स के ऊपर से हट जाता है, देयर गोना बी जस्ट मिन्स मीट. फिलहाल के लिए हम वो धीरे धीरे ट्रांजिशन कर रहे हैं टुवर्ड्स दैट लेट गेम, जहाँ पे नेक्स्ट फाइट is going to be the potential Rosh fight. But yes, स्काउट भी कर लिया, सेक्रेट को पता भी चल चुका है और यहाँ पे विजन भी उनके पास थंडर अवेकनिंग के पास अच्छी खासी है एंड सारे अल्टीमेट्स भी आ चुके हैं. सो दिस इज अ गुड टाइम. बट एक चीज़ यहाँ पे टीम लिक्विड ने अच्छा किया है कि बॉट लेन यहाँ पे पुश करवा दिया एंड एट दिस मोमेंट थंडर अवेकनिंग जस्ट डजंट केयर. And if they don't care, then Team Liquid know what is going on. That is the Rosh.
And the point is, are they willing enough to just get inside the Rosh pit? यहाँ पे I think एक illusion डाल रखा है just to get some vision, and देखिए Rosh भी मिल गया है. इसका मतलब ये है कि now they can force a fight, and fight force करने के फिराक में निकले ज़रूर है, and उनको मिल चुके हैं यहाँ पे प्यारे जाए. और इसी के साथ यहाँ पे रप्चर का इस्तेमाल ऑन पैंडमो, और देयर यू गो, एक के बाद एक हीरोज डाउन होते जा रहे हैं. माटुम्बा मैन को भी चेस कर रहे हैं. एक और यहाँ पे डाल दिया है अरीना, और माटुक देखिए किस तरीके से डैमेज टैंक कर रहे हैं. और पीछे से आते हैं मीके, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा. यहाँ पे सेक्रेड और ऑलरेडी डार्क मागो डाउन हो गए. एजिस भी बेट आउट करवा दिया, and they are on a turnaround. फाइट शुरू होते ही सबसे पहले जाते हैं टीम लिक्विड के पैंगो, लेकिन इंस्टेड ऑफ सेविंग दैट वन हीरो, टीम लिक्विड कहती है कि ठीक है एनिग्मा को टारगेट बनाते हैं. एनिग्मा को बाहर किया, वो ब्लैक होल जाता है. फिर अगला टारगेट बन जाता है उनके आपके ये ब्लड सीकर मार्स, दोनों के दोनों प्लेयर्स को. जैसा आपने बताया वो लेशरैक का जो प्ले था सो इम्पोर्टेंट. मटुम्बा मैन एज वेल जाने से पहले इतना ज़्यादा डैमेज डिश आउट करके गए थे. गॉट देम एक्सट्रीमली लो एंड मेड इट इजी फॉर हिज टीममेट टू फिनिश देम ऑफ. बहुत ही बेहतरीन फाइट ये आई है टीम लिक्विड की तरफ से, कंसीडरिंग दे वर द वंस दैट हैड मैसिव डिसएडवांटेज इसकी शुरुआत में. सो जॉनी आपने एक और आइटम देखा होगा, एंड वेस्ट भी नहीं कराया. नाउ दिस इज अ पोटेंशियल टियर 3 पुश, बट यहाँ पे लेशरैक का साइथ ऑफ वाइस अवेकन की एजेस वेस्ट, हाँ वो तो वेस्ट करवा दिया. एंड टियर 3 भी पुश करने वाले हैं. थोड़ा सा तो प्रेशर अप्लाई करेंगे और मे बी दे माइट डिसाइड टू स्विच लेन्स. बट मैं जो बात कहना चाह रहा था इज द फैक्ट कि यहाँ पे हेक्स कंप्लीट हो गया, साइथ ऑफ वाइस कंप्लीट. ब्लड सीकर का हमको ही पता है बीकेबी ड्यूरेशन रिड्यूस होते जा रहा है क्योंकि बहुत अर्ली बीकेबी उन्होंने लिया था. तो अब इस पॉइंट पे द मोमेंट आइदर दे इनिशिएट ब्लिंक इनटू हेक्स एंड ट्राई टू बर्स्ट हिम आउट, या फिर जस्ट काइट हिम टिल हिज बीकेबी एंड्स एंड देन हेक्स हिम एंड टेक हिम डाउन. और हेक्स के 2 टारगेट्स भी हो सकते हैं. यू कैन ऑल्सो ट्राई टू स्पॉट आउट एनिग्मा एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई योर हेक्स ऑन हिम, क्योंकि ही इज गोइंग टू बी अ फ्री किल अगर यहाँ पे हेक्स पड़ जाता है तो. नाउ टीम लिक्विड हैज एंटर्ड इनटू एन एरा, इनटू अ स्टेज जहाँ पे क्रैट आप भी आई थिंक सहमति रखोगे कि ऐसे अगर खेलते गए तो ये गेम उनके जेब में जाएगा. ये एग्जैक्टली जितनी जल्दी गेम खत्म करनी है उतनी जल्दी कर देनी चाहिए यहाँ पर टीम थंडर अवेकन को. बिकॉज ब्लैक होल कब तक उनकी जान बचाने वाला है. बिकॉज अगर जिस मोमेंट पे ब्लैक होल नहीं लगा उस मोमेंट में लाइफ स्टीलर इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है. और इंडिया 2 विकेट और खो चुकी है. 8 ओवर में 40 रन है उनके. आपको मतलब डोटा में सीएस का भी अब हम उसका अपडेट दे रहे हैं, डोटा का और क्रिकेट का. वर्ल्ड कप इंडिया बनाम पाकिस्तान, ये वर्ल्ड कप चल रहा है. हाँ T20 वर्ल्ड कप चल रहा है. आपको क्या देख रहे हो आप इतनी देर से? आई थॉट ये कुछ एशिया कप वगैरह होगा. एशिया कप खत्म हो चुका. I'm not into cricket. We are into TI. Yeah, I love मेरा स्पोर्ट ई स्पोर्ट है. अरे देखिए डार्क मागो खत्म हो चुके हैं. को कर दिया है कहर बिल्कुल बाहर. अभी भी 5 प्लेयर लिक्विड के तैनात एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द मिड लेन एंड दे वांट टू पुश. दे वांट टू गेट बैक बिकॉज अगर उन्होंने पोजीशनिंग को मारा है देन इट शुड बी वेल पेड ऑफ. और अभी जो लेशरैक है ही इज जस्ट गेटिंग दैट एक्स्ट्रा बक्स. मे बी शायद कोई आइटम की ज़रूरत होगी, बट आई लाइक दिस न्यू आइटम. मतलब यूजुअली वी डोंट सी ब्लड सीकर विद ब्लिंक, बट ब्लड सीकर ने ब्लिंक लिया है जस्ट टू बी इन मोर पोजिशन, गुड पोजिशंस. और लाइफ स्टीलर की अगर बात करें, लाइफ स्टीलर के पास भी काफ़ी अच्छा फार्म है. बीकेबी है उनके पास, डेसो, बैशर और आमलेट एंड ऑफ कोरोजन. ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्लेयर जो टाइनी एंड टैंगो दे वर आउट. उसके बाद बैकस वाज ट्राइंग टू यू नो फाइट अगेंस्ट मटुम्बा मैन, बट मटुम्बा मैन फिर भी काफ़ी परेशानियों में. और एक एक करके लिक्विड के सारे प्लेयरों को उनके दांत खट्टे करते हुए. बहुत ही बेहतरीन टीम फाइट. फिक्सेस आई थिंक आपको ना रणजी ट्रॉफी खेलनी चाहिए. अरे मैंने कोशिश किया था बट फिर मैंने नहीं मैं सिलेक्ट भी हो गया था. क्रिकेट खेलते हैं फिर मेरे को अरे नहीं कब आप खेला ही नहीं था. मैंने अपनी स्किल्स बचा के रखी है उस एक. हाँ सो मैं रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हो गया था, बट फिर मैंने देखा कि अगर मैं बाहर ज़्यादा धूप में खेलने लगूंगा तो मेरी जो जादुई त्वचा है वो खराब हो जाएगी. फिर मैं क्रैट जैसे देखूंगा. तो इसके लिए क्रैट सटल तरीके से बहुत कुछ बोल गए. फिर इसी कारण लेकिन ऐसे इंसल्ट कैसे करो. मैंने आपको आज तक कभी किया? वो आप इंसल्ट क्यों सोचे? मैंने ऐसा बोला क्रैट जैसे दिखूंगा.
तो मतलब आपने यही बोला ना कि अब बाहर इसलिए नहीं खेलते that you don't want to look like. No, I wanted Krat to be exclusive. There has to be only one Krat and there has to be only. ये lawyer तो है. अब बोल दो Krat is one and only. कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता. कोई Krat को और कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. बट यहाँ पे थंडर अवेकनिंग के प्लेयर्स रिप्लेस हो जाएंगे अगर ऐसे ही खेलते गए, क्योंकि अब यहाँ पे लिक्विड के प्लेयर्स एक ऐसे मुकाम पे आ चुके हैं जहाँ पे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है. अरीना फिर से वापसी इस्तेमाल. बट ये देखिए BKB स्टिल ऑन दैट लेशरैक, ट्राइंग टू डॉज इट आउट विद दैट ड्यूल सेप्टर, स्टेइंग अलाइव. माटुम्बा मैन सबको भगा भगा के मारने का प्रयास रह रहा है. पैंडमू किसी हाल में फोर्स स्टाफ करके वहाँ से निकल जाएंगे. एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था, बट मौत के सामने अपने आप को वहाँ से बाहर निकाला. बट कितनी बार ये जितनी बार भी छोटी छोटी फाइटें हो रही है ना, एंड द स्मॉल कैजुअलिटीज थंडर अवेकन इज टेकिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच रहे हैं. लिक्विड धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही है और टाइम लेट जाएगा, फार्म और बढ़ता जाएगा और ब्लड सीकर एंड एवरीवन, ब्लड सीकर एंड द ब्रदर्स विल बी फेसिंग लॉट ऑफ हिट एंड डैमेज कमिंग फ्रॉम लाइफस्टीलर. आई थिंक यहाँ पे you know Thunder Awakening is reaching a phase where they have to completely अपनी जी जान लगा देनी पड़ेगी. वो एक सुप्रीम ब्लैक होल अरीना, वो वॉम्बो कॉम्बो, एंड ऐसे हाई स्टेक्स गेम पे वो बहुत ज़्यादा फेल हो जाता है कभी कभार, क्योंकि क्या किया इन्होंने सेक्रेट ने इस समय ओनली मीके को पकड़ने की कोशिश की. एंड दिस वाज सच अ डेस्परेट अटेम्प्ट, क्योंकि बाकी जो कोर्स थे लिक्विड के वो अलग ही जगह पे फाइट्स ले रहे थे. एंड नाउ दिस इज प्रेशराइज देम. मिडनाइट पल्स का देखिए डैमेज कितना ज़्यादा डेविस्टेटिंग है. मॉटम मैन भी मेल्ट कर गए. तो यहाँ पे अभी भी पोटेंशियल है थंडर अवेकनिंग के पास. अगर होशो आवाज़ के साथ खेलें, अच्छे डिसीजन मेकिंग करें, तो शायद गेम में वापसी हो सकती है. बट इसी के साथ यहाँ पे वापस से एक और प्लेयर पिक कर दिए गए थंडर अवेकनिंग के. अरीना खोल दिया गया है. काफ़ी ज़्यादा डैमेज दीवार पे चिपके हुए हैं. यहाँ पे ब्लड राइट आता हुआ ब्लड सीकर अपने ताज़ा तरोश फॉर्म में आ जाएंगे. एंड देयर यू गो इज ऑन द चेस. एंड जहाँ पे लग रहा था कि टीम लिक्विड इज टेकिंग अ ड्राइवर्स सीट इन द गेम, ये जो बायबैक था ब्लड सीकर का रियली हेल्पिंग देम आउट. एंड 3 प्लेयर्स यहाँ पे लिक्विड के डाउन कर दिए गए हैं. वेल लेट्स सी, 3 प्लेयर्स डाउन किए गए हैं और इस पे क्या कन्वर्जन यहाँ पे मिल सकता है थंडर अवेकनिंग को, ये हमें देखना होगा. थोड़े से और टावर्स तोड़ने की कोशिश करेंगे. टॉप टियर 2 अभी भी खड़ा हुआ है, तो मे बी दे कैन अप्लाई प्रेशर देयर. मिड लेन पे तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा कहर बरसा चुके हैं. क्रीप वेव पुश कर रही है और वेल मिड टियर 2 के लिए यहाँ पे पहली प्रायोरिटी बनाई जा रही है थंडर अवेकन के द्वारा. एंड आई थिंक एक इजी टेक डाउन अभी भी फोर्स बायबैक. आई थिंक एटलीस्ट आउट ऑफ मीके तो करना ही पड़ेगा उनको. नहीं जरूरत नहीं है. द ओनली रीजन अभी थंडर अवेकन इस फाइट में टिकी हुई है, इस मैचअप में टिकी हुई है और इस टाइम पे टिकी हुई है, उनके पास एक एनिग्मा है जो उनको हर बार एक अच्छी खासी कंसिडरेट एडवांटेज ला के दे रहा है. मैं वही कह रहा हूँ, मैं उस समय से डर रहा हूँ, मैं उस टाइम से डर रहा हूँ जब वो ब्लैक होल नहीं लगेगा. उस वक्त रेडियंस के पास वो इतना अमाउंट ऑफ डिसेबल कहाँ से आएगा, क्योंकि इस वक्त लेशरैक इज जैग्ड, लाइफ स्टीलर पे बहुत सारा फार्म है, ये चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी. देखिए एटलीस्ट इन्होंने सूंघ तो लिया है रोशॉन की महक आ चुकी है टीम थंडर अवेकनिंग को, और उन्होंने शुरुआत भी कर दिया है. बहुत अर्ली कमिटमेंट्स देखिए आपने. क्रिस्टल मेडन की अल्टी भी इधर इस फाइट में चला दी और यहाँ पे जल्द से जल्द मेल्ट डाउन करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये टाइनी लाइफ स्टीलर को लेके अंदर ही घुस रहे. उससे पहले इन्होंने रोशान तो पिक कर लिया है, बट वी नो टीम सीक्रेट दे वांट टू गो इन. जाए जा चुके हैं ऑलरेडी अंदर, काफ़ी प्लेयर्स को स्टन कर दिया. एक परफेक्ट ओपनिंग और इस बार यहाँ पे ब्लैक होल में पकड़ने में कामयाब 2-3 प्लेयर्स को. उसके साथ मिडनाइट पल्स भी डाल रखा है. काफ़ी ज़्यादा डैमेज आउटपुट आ भी रहा है. ऑलरेडी माटुम्बा मैन डाउन हो चुके हैं अलॉन्ग विद द टाइनी एंड अनदर वन फॉल्स डाउन. मीके गोज एंड यहीं पे ही तो गेम चेंज हो गया. रोशान भी है, बायबैक किया था कुछ प्लेयर्स ने, बट हाउ लॉन्ग इज जाय गोइंग टू सर्वाइव. स्वॉशबकल करके अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे. मैथ्यू ने उनको दे दबोचा है, रोक लिया है और टीम वाइप. दिस मीन्स आपको अपना जो बायबैक से एक बार स्टेटस के ऊपर नजर डालें तो yes, Matu has the buyback, Tiny has the buyback, but no buyback on Leshrak, and this is it. This is where I think they have to build up a substantial amount of lead. And bottom lane pushed अभी तक नहीं है, तो mid racks तो जाएगा ही जाएगा, but उसके साथ are they directly going for the ancient? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ancient के लिए अब जाते हैं तो एक अच्छा खासा चांस बन सकता है, क्योंकि by the time they try to force out the
बॉट लेन, तब तक काफी देर हो जाएगा, बाकी कोर जिंदा हो जाएंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज नाउ टीम थंडर अवेकनिंग समहाउ दे हैव डन इट। पूरा जो श्रेय जाता है वो सीक्रेट को जाएगा। फिर से एक शानदार ब्लैक होल, मिडनाइट पल्स, एंड यस आई वाज राइट, दे आर गोइंग इनडीड फॉर द एंशिएंट एंड मैथ्यू अर्ली ऑन। काफी ज्यादा प्रेशर स्प्लिट अर्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं रूबिक के साथ, वो स्पेल उन्होंने स्टील किया था। एंड देखिए जिस गति से वो टावर्स गिर रहे हैं, पकाज नोज 10 सेकेंड तक तो अब कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि लाइफ स्टीलर आ जाएंगे, फिर से थोड़ी सी फाइट पोटेंशियल बढ़ जाएगी। बट मैथ्यूज और यहाँ पे टीम लिक्विड के प्लेयर स्मोक आउट कर रहे हैं, बट इसको अच्छे खासे तरीके से डिटेक्ट भी कर लिया मैथ्यूज ने। पूरा यहाँ पे डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं, फिर से मिडनाइट पल्स के अंदर इनको फाइट लेना पड़ेगा। पकास का रोशान यहाँ पे ऑलरेडी एजिस वेट कर दिया गया है, जहाँ पे अभी थोड़ी देर में लेशरैक भी आ जाएंगे। बट नाउ टीम थंडर अवेकनिंग देयर ऑन द रिट्रीट, एक और पिक निकाल चुके हैं, मे बी नॉट, एंड दिस इज नॉट अ पॉइंट वेयर इट इज जीजी, द फाइट इज स्टिल ऑन and Sacred and everyone from Thunder Awakening, they're just on a retreat. And आप देखिए मैथ्यूज तो यहाँ पे he's gonna fall down as they're on a chase back, and Zai ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहे हैं हर एक प्लेयर को, स्वॉशबकल लेके चारों तरफ भी यहाँ पे अपना जलवा दिखाता हुआ। बट इस मोमेंट पे BKB और TP out is the solution, and Dark Mago could go down as consolation. He will be going down. Yeah. Important picks. I mean, yeah, you were right. GG तो नहीं था वहाँ पे, सारी की सारी थंडर अवेकन बैक ऑफ करती चली गई जैसे ही वो एजिस पुल आउट हुआ ऑन दैट ब्लड सीकर। लेकिन इस एक टीम फाइट से इतना ज़्यादा वैल्यू मिला है थंडर अवेकन को कि टीम लिक्विड की एक छोटी सी गलती इज गोइंग टू रिजल्ट इन। I did not like Matthews there. I did not like Matthews there because I really felt कि टाइनी को उसके अंदर घुसने देना ही नहीं चाहिए था। उनको उससे पहले ही अपना फर्स्ट किल, या फिर फर्स्ट किल के साथ आप फॉलो अप कर सकते थे स्प्लिट अर्थ का, सिंपल सा चीज़ कर देते, शायद वैल्यू मिल जाता, शायद वहीं पे शट डाउन हो जाता, क्योंकि इतने डिसेबल्स तो थे टीम थंडर अवेकनिंग के पास। क्योंकि अब टीम लिक्विड दे आर ऑन अ कमबैक स्प्री। अब मार्स 70 सेकंड के लिए इस गेम से बाहर है, तो इसका मतलब ये तो बॉटम रैक तो जा ही रहा है। फिर से एक और BKB शानदार ब्लड राइट के साथ फॉलो अप करता हुआ, वाओ व्हाट अ कॉम्बो, और फिर से माटू को घर का रास्ता दिखा दिया गया है और एक एक करके डैमेज देने का प्रयास, बट पकास को इस बार पिक ऑफ कर दिया जाएगा। अब देखिए इस टाइनी को यहाँ पे टॉस किया था और गिर जाएंगे यहाँ पे हमारे प्यारे मैथ्यूज, और ये फाइट लेफ्ट राइट हर दिशा में जा रहा है। और नाउ एट दिस पॉइंट लुक एट लेशरैक जस्ट मूविंग अराउंड विद दैट ड्यूल सेप्टर ही हैड, and still trying to get that tier 3 यहाँ पे खींचने की कोशिश Sacred को, and Sacred falls down। and जो मैच लग रहा था कि टीम थंडर अवेकनिंग जीतने वाली है, सडनली टीम लिक्विड ने उसकी काया पलट दी। Let's see. टीम लिक्विड 3 इंपॉर्टेंट पिक्स निकाले यहाँ पे, एक ब्लड सीकर, CM, मार्स, तीनों को शट डाउन किया था, लेकिन अगले 17 सेकंड में वापसी होगी मार्स की, सॉरी CM की। अब 10 सेकंड में लगभग मार्स वापस आ जाएंगे। ब्लड सीकर को वापस आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, प्लस बाय बैक भी अवेलेबल नहीं है। इम्पॉर्टेंट रहेगा टीम लिक्विड के लिए कि जो भी ऑब्जेक्टिव सिक्योर करने हैं अभी कर लिए जाएँ। दे हैव गॉन फॉर द रैक्स इन द बॉटम। I don't think like Lifestealer or Tiny के बिना they want to take a fight. I think fight तो नहीं ले पाएंगे। I think clear out some vision, वो एक at this moment what is going to be ideal is to try to push the lanes a little bit against Team Thunder, and then next Roche fight is going to be like, I think the decider Roche fight, जो भी वो fight जीतेगा he will have a driving seat, and for Thunder Awakening it is again going to be that black hole. Yeah, that changes it all. अगर वैसा पिछला जैसा I believe टॉप लेन के क्लोज जो फाइट हुई थी वैसा वॉम्बो कॉम्बो दिख जाए तो मजे ही आ जाएंगे फिर से विद द ब्लैक होल और अरीना एक साथ डाल के। That was insane. That indeed was. अब इस फेज में हम लोग आ चुके हैं कि ये मैच जैसे बोलना पसंद करते हैं कि पेंडुलम की तरह हो चुका है, कभी इधर तो कभी उधर जाता हुआ। और आई एम रियली इंटरेस्टेड कि थंडर अवेकनिंग इतनी देर तक टिक पाई हैं, एंड सरप्राइजिंगली दे हैव एग्जीक्यूटेड सम गुड वॉम्बो कॉम्बोज। एंड नाउ जैसे हमने कहा था, इट्स गोइंग टू बी अर्ली रोश स्पॉन जस्ट बाय द वे जॉनी, एक अर्ली रोश स्पॉटिंग, एंड आई थिंक मीके विल बी द फर्स्ट वन जी जो इसका फायदा भी उठाएंगे।
और ये देखिए विन प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे ये जो 46% पे आ चुका है वो कम होता जा रहा है हर एक बीतते सेकंड के साथ। 12,000 का नेट एडवांटेज टीम लिक्विड के पास। बट अगेन जैसा आपने पहले मेंशन किया वो चेन एबिलिटीज पे सारी बात आ जाएगी कि कितना अच्छा सिंक अप देखने को मिलता है। वॉम्बो कॉम्बो अगर देखने को मिलता है तो then maybe Thunder Awaken will just go ahead and close out the game. Well, let's see. और यहाँ पे 38-31 का स्कोर लाइन हो चुका है, 11,000 की लीड। और ओह पकास, ये क्या गलती कर दी आपने। और अगर इसकी भनक लग चुकी है टीम लिक्विड को कि ये तो जा रहे हैं इस रोश पीट के अंदर। डबल डैमेज पड़ा है वहीं सामने। पीके भी बेट करवा दिया जॉनी, वो भी ब्लड सीकर से। अरे 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 हाय माता रानी, गलतियां गलतियां गलतियां। यहाँ पे थंडर अवेकनिंग ऐसे बड़े फेज में करते हुए जिसका भरमाना पड़ सकता है उनको। और टीम लिक्विड आप देख सकते हैं डैमेज भरपूर अब इस लाइनअप के अंदर। और यहाँ पे एडिलॉन्स को भेजा ज़रूर था कि ढूंढ निकालें। फिलहाल के लिए टीम लिक्विड के मार्टू, ओह ही इज ऑलमोस्ट प्रीटी फैट राइट नाउ, लाइक और थोड़ी देर में यू आर गोइंग टू सी अ लाइफ स्टीलर that can rip people apart, but बात वही घूम फिर के आती है, how are they gonna sustain that BKB। वो BKB को अगर avoid कर दे, BKB into midnight pulse, then I think team liquid can win fights easy। So I think priority रखना पड़ेगा किसी तरीके से, backline से ही Sacred को ढूंढना पड़ेगा। Can't let him have that perfect opening, that perfect BKB। But at this point, Zai doing pretty well by himself, did not have the best of the games initially, but धीरे धीरे he's picking up farm। So Boots of Travels उन्हें बना दिया 5-man smoke gang। they know कि यहाँ पे रोश फाइट कितना ज़्यादा important है। मीके अकेले घूम रहे हैं एंड yes लिक्विड को पता चल चुका है कि स्मोक गैंग हुआ है, तैयार बैठे हैं फिराक में कि एक बार आप इस गड्ढे के अंदर आइए फिर हम आपको बताते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे काफ़ी आइसोलेटेड है टीम थंडर अवेकनिंग के प्लेयर्स। यहाँ पे गैंग शुरुआत इसकी हो चुकी है ऑलरेडी, लिच किंग को डाल दिया गया है नीचे। अब जो दूसरे शिकार होंगे वो होंगे प्यारे टाइनी। लिच ने बायबैक ज़रूर किया था बट ये बायबैक या डाईबैक बन जाएगा थोड़ी देर में ही पता चलेगा, क्योंकि ब्लैक होल का भी इस्तेमाल मार्टू को कर दिया है ख़त्म। दूसरी बार अरीना का प्रयोग और लेशरैक दुम दबा के भागने की कोशिश में, बट कितने दूर जाएंगे, कितना खेलेंगे यहाँ पे इस मोमेंट पे सारे प्लेयर्स। यहाँ पे टीम लिक्विड के अपने बायबैक्स फोर्स करते हुए रूबिक को डाउन कर दिया गया है अगले मैच 120 सेकंड तक, बट अभी के लिए फाइट अब बरकरार होती हुई। मार्स भी डाउन हो गए हैं बायबैक करके, वो भी इस फाइट के अंदर आए हैं, बट यहाँ पे किसी भी हाल में जब सेक्रेड जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। एंड व्हाट अ टर्न अराउंड बाय लिक्विड यूजिंग दैट ब्यूटिफुल बायबैक एंड गेटिंग ऑल दोज kills, क्योंकि अब सारे कोर्स जो है थंडर अवेकनिंग के दर आउट फॉर लाइक द नेक्स्ट मिनट एंड हाफ, विच मीन्स 5 बायबैक्स उनके तरफ से और सिर्फ अकेले मार्स ने यहाँ पे बायबैक किया था। एंड दिस इज़ प्रीटी मच जीजी's, क्योंकि ये रोश भी जा रहा है उनके नाम और यहाँ पे पुश करेंगे। बायबैक स्टेटस देखिए, मात्र प्रकाश के पास बायबैक था और वो प्यारी क्रिस्टल मेडन, और आप 3 हीरोज़ के साथ ये टीम लिक्विड के साथ डील नहीं कर सकते। एंड क्रैट ने इसके बारे में बातचीत करी हुई थी कि दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव योर enigma around in all those fights, and no complaints here. It was just the buybacks being absolutely perfect for team liquid and वो value भी deliver किया। I mean definitely जैसा आपने mention किया, वो buybacks instantly आते चले गए और I think Thunder Awaken के पास कोई backup plan नहीं था कि इससे कैसे deal करेंगे। Maybe they could have just reset after getting those cores, जैसे ही लेशरैक को डाउन किया, पैंग का पिक मिला, they could have backed off, reset and then come back,
बट नहीं, फाइट को कंटिन्यू करते चलेगा और टीम लिक्विड ने उसी बात का मौके का फ़ायदा उठाया। और अब देखिए रैक्स मिड पे जा रहे हैं, बॉट के तो कब के जा चुके थे, टॉप लेन भी खाली हो चुका है, मेगा क्रीप्स आएंगे। दिस विल इवेंचुअली एंड अप इन अ जीजी। थंडर अवेकन के ऑलराइट 10 सेकंड में द ब्लड सीकर इज बैक, 15 सेकंड में रूबिक वापस आ जाएंगे, एनिग्मा को 20 सेकंड और लगेंगे। तो लिक्विड की तरफ से ये रीसेट, इट्स वेरी स्मार्ट। अब क्या गेम तो लगभग खत्म ही समझ लो, क्योंकि 3 साइड मेगा जब हो जाता है तो नो विशाल का एक क्रीप स्पॉन होते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज रहता है। एटलीस्ट क्रिस्टल मेडन की तो आरती उतार देंगे इस समय, क्योंकि ऐसे आप बोल सकते हो। देखिए कितने बड़े बड़े क्रीप्स आ रहे हैं और यहाँ पे सीमित कर दिया है थंडर अवेकनिंग को अपने ही बेस के अराउंड। अब पुश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, एंड पूरा जो मैप कंट्रोल है वो थंडर अवेकनिंग अपने नाम कर जाएगी। लिच किंग ने ले लिया है ये रिफ्रेशर शार्ड, इसका मतलब 2 प्लेयर्स को आराम से खींच सकते हैं, 2 चेन फ्रॉस्ट लग सकते हैं। और लेशरैक के पास है वो शानदार गोल्डन एजिस, जिसको अगले महज 3 मिनट तक उनके पास ही रहने वाला है। तो एक और फाइट यहाँ पे टीम लिक्विड किसी भी मोमेंट पे फोकस कर फोर्स आउट करना चाहेंगे, एंड दे वुड जस्ट वांट टू एंड इट। एक और टीम फाइट एंड वो इस मैच को यहीं पे अंजाम तक ला के रख देगा। ये वाली अगली वाली तो ये खुद ही फोर्स करेंगे, दे हैव एवरीथिंग दैट दे नीड। बस थंडर अवेकन के एक किसी प्लेयर की गलती का ये इंतज़ार कर रहे हैं। एक बारी वो गलती हो गई, टीम लिक्विड सीधा गेम एंड करने के बारे में उनके मतलब ख्याल तो अभी आ ही रहे हैं, ख्याल आएंगे क्या। क्रीप वेव्स भी काफ़ी अग्रेसिवली आगे पुश कर रही है, जैसा सुपर मेगा क्रीप जो है वो आ चुके हैं। तो अब तो ये वेव्स एक ही डायरेक्शन में जाएंगी। लुक एट दैट stats again, looking very impressive as always. I mean हमेशा जितने भी टीम लिक्विड के मैच हुए, this is the one person who has been like playing on point every time. Oh yeah, I think more than that, उनकी जो सर्वाइबिलिटी रह रही है फाइट्स में काफ़ी बढ़ चुकी है। आप देखिए यहाँ पे ब्लड सीकर फुल फार्म तो हो गए, नीड्स मे बी दैट अबिसल ब्लेड, एंड देन could think about dealing with life stealer, like a little 1v1 fight. Could succeed. As much damage will get so much to do, but एक आखिरी सांस वाली जो फाइट है, थंडर अवेकनिंग लेना चाहेगी टीम लिक्विड के खिलाफ। और इस फाइट में अगर विजय प्राप्ति करते हैं तो शायद इस गेम में उनके रहने के चांसेस रहेंगे, नहीं तो पूरा का पूरा जो गेम नंबर 1 था, जहाँ पे टीम थंडर अवेकन ने काफ़ी देर तक मोर्चा संभाले रखा है, क्योंकि ये गेम कायदे से 40 मिनट तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। बट सेक्रेड और उनके जादुई करिश्मों ने गेम को अभी तक उनके खेमे में रखा था, बट फिलहाल ये गेम की आखिरी फाइट हो सकती है। बहुत ही शानदार ब्लैक होल, फिर से 2 कोर्स को पकड़ा है, यहाँ पे मिडनाइट पल्स भी है, तो डैमेज पड़ जरूर रहा है। और उसी के साथ यहाँ पे डार्क मार्क हो, जितना डैमेज हो सके उतना डील कर रहे हैं। माटू यहाँ पे 125 सेकंड के लिए बाहर है, बट अभी भी एक एक करके प्लेयर गिर रहे हैं। जाई यहाँ पे नेक्स्ट होंगे जो शिकार हो चुके हैं। फ्रीजिंग फील्ड भी आता है, अब देखिए डैमेज भी आ रहा है, बट स्टिल समहाउ बकास अभी भी जिंदा थे थोड़ी देर के लिए। और बट इसी के साथ यहाँ पे बायबैक करना पड़ रहा है। 2 प्लेयर्स यहाँ पे टीम लिक्विड के कोर्स इनफैक्ट टेक डाउन हो गए, अब तीसरा भी जाने वाला है 2 पकास। बट ये जो प्रेशर आ रही है ऑन टुवर्ड्स द टॉप लेन, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर लिक्विड विल बी ऑन दैट बैक फुट, एंड फॉर थंडर अवेकनिंग इनको एक डेथ पुश के लिए जाना पड़ेगा। दे विल हैव टू फोर्स आउट, क्योंकि अगर बायबैक स्टेटस की तरफ एक बारी नजर डालें, जॉनी किसी के पास बायबैक नहीं है अभी डायर साइड के लिए। तो अगर ये 80 सेकंड का फायदा उठा सकते हैं टीम थंडर अवेकनिंग के प्लेयर्स, शायद ये मैच उनके झोली में चले जाए। फिर से ये वापस वही वाली बात शुरू हो रही है, आरएनजी एंटिटी वाली, जो कुछ ही दिन पहले हमने विटनेस करी थी। अब वो बायबैक्स के अराउंड पूरा जो गेम है वो जा रहा है, बट ये मेगा क्रीप्स, सुपर मेगा क्रीप्स इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा धक्के लगा सकते हैं उस एंशिएंट के ऊपर भी। दे नीड टू फिनिश ऑफ द एंटायरिटी ऑफ लिक्विड इससे पहले कि थंडर अवेकन गेम को क्लोज करने के बारे में सोचे। चलिए, लेशरैक को तो पकड़ लिया गया, टाइनी ठीक उनके पीछे मौजूद है, लेशरैक को फिनिश ऑफ किया गया। टाइनी अब अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करते हुए, एंड थंडर अवेकन क्योंकि ये बाकी के टीयर जो टर्रेट्स थे जो एंशिएंट डिफेंड करते हैं उनको टेक डाउन कर चुके थे। अभी बेस रेस चल रही है ये सुपर मेगा क्रीप और थंडर अवेकन की टीम के बीच में, एंड थंडर अवेकन सीधा एंशिएंट पे हमला बोलते हुए एंशिएंट को डिस्ट्रॉय करने की अब फाइनली कोशिश करेंगे। एंड देयर इज नथिंग लिक्विड कैन डू अबाउट दिस, दे विल वॉच देयर एंशिएंट डाई।
क्लिफ था, क्लिफ लगा दिया गया है, पीछे से टाइनी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। 8 सेकंड में वो लिच वापस आएगा, उसके बाद 24 सेकंड में पैंगलियर वापस आएगा, 17 सेकंड बाद लाइफ स्टीलर वापस आएगा, लेकिन इतनी देर तक कोई डिले नहीं कर सकता। टाइनी भी जा चुके हैं, लिच इज बैक बट इट्स नॉट गोना मैटर। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, थंडर अवेकन गेम जीत रहे थे, गेम हारे, फिर गेम जीत रहे थे, फिर गेम हारने लगे, फिर गेम जीतने लगे और जीत गए। आई थिंक आज के शाम का सबसे एंटरटेनिंग मैच इसको कहेंगे। ये गेम फुल नहीं पैसा था वसूल, फुल पैसा वसूल जो होता है, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका यही मानना है। विश्व आई थिंक टीआई का वन ऑफ द बेस्ट कमबैक्स रहेगा जो यहाँ पे थंडर अवेकनिंग ने पुल ऑफ किया है, क्योंकि we were talking about the prospects की गेम अगर 35 मिनट्स मार करके प्लस जाता है, there is no chance आ सकता है। Only one player can change it and that had to be Sacred, and he was the man. Given the moment, Rizet the man was Sacred. और एनिग्मा के साथ I think we can't take anything away from Dark Mago as well, और पकाज also. I wonder आज इन्होंने मैथ्यू ऐसे कंट्रोल किया। अरे मैथ्यू ने आज काफी अच्छा खेला। आई थिंक रूबिक के साथ ये जो ड्राफ्ट एग्जीक्यूट किया था, जो इंटेंशन था, वो टीम लिक्विड को के खाने पड़ी। एंड क्रैट, मतलब अचंभित सभी हो चुके हैं। यू आर लिटरली स्पेल बाउंड। मैंने तो पहले ही बोल के चला गया था कि एक ही रीजन जिसके वजह से अगर लिक्विड हारेगी तो वो वही होगा। और मजे की बात ये है कि आज हमारा चौथा दिन है और इतने अच्छे ब्लैक होल हमने पिछले 3 दिन में नहीं देखे। या डेफिनेटली और वैल्यू ब्लैक होल, इंपैक्टफुल ब्लैक होल्स आज हमने जो देखे, लाइक दे वर रियली गुड। मतलब क्या कहना चाहेंगे जान? मैं कुछ नहीं कह रहा, आप बोलिए। बट लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स कि इस गेम के अंदर जो क्रेजी हाइलाइट्स बने हैं। ओह गॉड, हां वो आएगा। आई थिंक दैट प्ले नीड्स टू बी देयर। ये प्ले, दिस वाज अ गेम चेंजिंग वन। सो आई थिंक वन थिंग दैट लिक्विड वर डूइंग रॉन्ग मल्टीपल टाइम्स, दे वर गैदर्ड एंड फाइटिंग, गैदर्ड अ लॉट, एंड हमेशा सेक्रेड वेट कर रहे थे टाइनी का। ठीक है, द मोमेंट टाइनी कम्स ही न्यू की लाइफ स्टीलर उनके अंदर ही इन्फेस्टेड होंगे, और उसी टाइम पे ही वो ब्लैक होल खोल देते थे। उनका एक ही मतलब दिमाग में चलता था कि जीने दो मीके को, मीके को हम बाद में देख लेंगे, पहले ये टाइनी और लाइफ स्टीलर की जिंदगी खराब करो। वो आते थे, मिडनाइट पर्स डलता था, ब्लैक होल आता था, और उसके बाद मार्स का अरीना भी खुल जाता था, विच काइंड ऑफ लाइक लिटरली मेल्टेड डाउन द प्लेस, और उसके बीचों बीच फर्स्ट कभी कभार जाते थे जाए। एंड देयर वर मोमेंट्स वेयर टीम वाइब्स वर आल्सो हैपनिंग। एक पॉइंट पे लगा भी था कि शायद हाँ टीम लिक्विड तो हो गया, जीत गए, बट देन फिर से जादू सेक्रेड का, और 32 असिस्ट एनिग्मा के साथ। बट उसके बावजूद भी मैं कहूंगा दिस इज स्टिल नॉट अ गोल्डन रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ गुड, हाउ इम्पोर्टेंट, हाउ एसेंशियल दैट एनिग्मा गॉट, एंड लिटरली वन देम दैट गेम। या डेफिनेटली, बट अलोंग विद दैट आई थिंक टीम लिक्विड की तरफ से मैं आई मीन फिक्सेस आपसे जानना चाहूंगा, जीता हुआ गेम हाथ से निकला है। बहुत ज्यादा पिटाई करी थी इन्होंने थंडर अवेकन की एट वन पॉइंट, बट थ्रो 3 साइड मेगा कर दिया था क्रैट टीम लिक्विड ने। 3 साइड मेगा किया था, और इट वाज ऑल अबाउट दैट फाइनल फाइट जो वहां पे बॉट साइड पे हुआ, और उसके अंदर भी इन्होंने पिक कर दिया प्लेयर्स को। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन सेम स्ट्रेटजी, जैसा मैंने बोला, इट वाज आई थिंक टीम लिक्विड weren't really crafty with their methods। बारंबार एक ही चीज का प्रयास कर रहे थे, टाइनी के अंदर इन्फेस्ट, टाइनी का अंदर जाना, वंस दे डीलिंग विद दैट, और कुछ उस फाइट में बच ही नहीं रहा था। मीके कितना ज्यादा डैमेज दे सकते हो, चलिए, क्योंकि एक बार आपके दो सबसे स्ट्रॉन्ग हार्ड हिटिंग चलिए टाइनी भी एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा एचपी के हो गए थे, दे वर जस्ट मेल्टिंग अवे, और उसके बाद दे कुड इजीली फोकस ऑन द रिमेनिंग सपोर्ट्स, एंड जाई तो ऐसे कूदते कूदते जा रहे हैं और उनको अरीना के अंदर रख के मार रहे हैं। And Pakaz also as a carry, his transition was really nice, especially when we thought कि late game तक he's gonna fade out. He made himself there, and he was dishing out major damage in those team fights. I mean, it was an important game, but Liquid अभी एक game down है, and अब pressure तो feel हो रहा होगा। आज already एक बड़े नाम को हम बाहर होते हुए देख चुके हैं। It was PSG. Yeah. As Liquid next. 2 बड़े नाम बाहर हुए। Yes, 3 हो सकते हैं क्या? और उसमें से 2 ऐसी टीमें जो टीआई जीती हैं। PSG कब जीती? नहीं, ओजी एंड लिक्विड बाहर नहीं हुई, खेल रही है अभी, मतलब अगर हो गई तो। अच्छा, क्रैट मेरी प्रेडिक्शन सही गई है आज की वैसे सारी। अरे पकड़ा जाता, मतलब होस्ट। देखिए, ये
you know हम ऐसे like बन चुके हैं कि जहाँ पे ऐसे हो जाता है ऐसे निकल जाते हैं ऐसे we are slim shady बीके भी लगा देते हैं टक से वापस बीके भी किस लगा करके देते हैं निकल जाते हैं It's okay, it's super okay. जी अच्छा चलिए हमारी एनालिसिस मेरे ख्याल से इतनी थी अभी इंग्लिश डेस्क पे चलते हैं देखते हैं हाँ वहाँ पे क्या चल रहा है Not secured, but it was definitely. Would have lost like that. Yeah, Right. it was favourite for them. Like I mean, they had the outpost. They could have had buybacks. They had were everything. farming. Yeah. Sure, the team fight's going to be hard, and there was a very low cooldown on the Enigma with the black hole, if I'm Like correct, 80 because seconds I or think, something. yeah. So, but still. But Thunder Awaken, I mean, they played so well. They were bold, they were did. brave, they took the right fights. Like the fact that they got those 5 buybacks from Liquid in the first place was because they were able to seek out the right engagement, and they didn't have to use their buybacks in that fight either, right? So one of the main reasons they won the game there at the end is because Picasso had his buyback. Well, this has been an adrenaline match, and to calm us down, we need a soothing voice. So let's head over to Purge. Thank you, James. Appreciate it. Start things up. We have a little bit of an update from the Doppler radar at the moment. We have huge, powerful Western European drafts that are washing over the region, really dominating everything. Consider taking shelter, limit exposure, maybe get on some airplanes if things go really bad. This is really tough timing because residents are still reeling from the previous cold front. It's resulted in a handful of false starts and countless disappointments across the region. We can also jump over to the 5-team forecast here. First off, we're going to have Aster overperforming expectations. They're doing great, but unless they win TI, there's going to be clouds in the sky, and that's going to really take a lot away from their accomplishments. So, on the other hand, Liquid having an amazing run. I think they're doing great, but they've had to keep eliminating their friends. Big downers there. Thunder Esports in their element. Everyone else is having a really rough time, but it's great for them. They're ready for this. They're ready, doing well. Everything's going great. And Thunder Awaken, off to a great start. Sunny, perfect day. Even if they lose here, they're already exceeding expectations. So until now, let's jump over to our reporter. He is on site right now. Let's check in with him. Neil? Yeah. Thank you very much, Purge. Well, I'm here at the foot of Mount Velusius. It's a damn shame. You know that in years past, we often faded banners here at TI of all the teams that were eliminated. Here, unfortunately, we are now sacrificing them to the gods. As you can see, Entity has already fallen. OG off to the side. Boom off in the distance. It is a damn shame what happens to all these teams. I'm hot. I'm cold. I'm sad. It's heartbreak. It's just sadness all across the globe. LGD has fallen also. And dare I say I might see a Liquid off in the sky. I have to go, my friend. I have to go. But good luck back in the studio. Incredible reporting from the ground by Neil Tsunami. We'll get him an update from him later. Hopefully he makes it through. Back to you, James. Thank you very much, Purge. Yes, a lot of TI weather here, and the teams are doing their best to weather the storm. But we'll see if Liquid will be able to come back in Game 2. But before we get him back onto stage, let's check into the arena with Slacks. Hello out there. The arena's absolutely on fire after that game. It was insane stuff. We're going to get through this real quick. In one word, summarize that last game. Heart attack inducing. Okay, that's technically a hyphen. That works for me. One word. Madness! Madness indeed from this arena. But anyway, let's take a deep breath. We have to get to a Game 2. So, to calm you guys down, I'm going to send you over to some more of our finalists for the short film contest. We've got 2 fantastic SFMs coming your way. A little bit of multiverse, a little bit of Mega Creep comeback. You might have seen something like that before. Let's take a look. It's in the bag. Stand and fight. Stand and fight. Feel the burn. The battle resumes.
Welcome back. Yeah, please support the amazing people that have entered the short film contest. You can go onto Steam to do some voting there, and I'm sure we've got a little bit more to come, but they are available for you to take a look and enjoy in your spare time. So I believe the teams are ready to come back out for game 2. Let's get going. Panel, they're back. Thunder Awaken returning to the stage. They've already done what no South American team has yet done before. They've made it to the top 6. They could be moving on in the top 4, 1 game away. 1 game. They are just an amazing example of what giving South America more slots will do. The region has developed, the players have gotten stronger, you're seeing all this representation, they're doing amazing. I'm so happy for them, legitimately, just so happy. They definitely did need some time, same like SCA, right? For these veterans to become those strong position 5s and 4s that can captain the teams. Matthew, a perfect example. They needed a little bit of time, but once they got it, I believe they'll just become unstoppable. SCA and SA together. T-Governor, Team Liquid had to go backstage. Blitz was watching the whole thing. Now, he's not that big, but he gives damn good pep talks. Yeah, he's got a good aura to him. Yeah, this is a game for Liquid at least that losing it, you can shrug it off as that was a bit of a blunder, right? But you can also then go, we just need to reset ourselves mentally. That it's not about Dota anymore right now, in this best of 3, for Liquid at least. It's about getting yourselves back into a position where you can think about the game logically. You're not playing with the heart and the passion and the kind of the dismay of what happened in that first game. Like a lot of teams, after losing that type of game, they'd rip themselves to shreds going into a game 2. But I feel like Liquid, when you have Blitz and the support staff, you know, Jarek's Jab, the entire team around them, they'll be able to recover and just reset themselves psychologically so that this game 2 isn't going to be some Thunder Awaken masterclass on early game aggression. And it wasn't, as you say, they didn't really throw something away that was guaranteed because it didn't always look like Liquid were going to win that match at times. No, definitely. They had a ton of clutch moments. If you even think about it, 5 minutes prior to that, they had that amazing Shrine fight where they had all 5 buybacks used. That's not something that you usually do when you're in a full controlling position. I believe that Thunder Awaken, they should be happy about the way that game went, and if they have lost, it might have broken them, but obviously they didn't lose, and the comeback might make them even stronger for game 2. Sheepo, what do you think these two teams feel about each other in terms of their team fight ability? You know, do we feel stronger here against our opponent, or do they feel stronger there? I have always felt much better about the Thunder Awaken early game, and last game was no exception. I think the way that they played around Zai was fantastic. They used their lane swaps. They have this Bloodseeker versus the Pango that ends up happening anyway in the other lanes. They crush him there. He TP's bot. They black hole him, kill him again. He goes back bot. Now they've brought Bloodseeker down there. They rupture him. Like, his game got so gimped, and it's like taking advantage of that, pressuring someone, putting them out of comfort is really effective, and kind of halted Liquid's game a little bit until they were able to get those kind of clutch mid-game fights. All right, and Lizard, do you see any kind of just
glaring differences between the two teams and their play styles? Well, for me, Liquid was, we might disagree on this, but for me, Liquid was never like that early super skirmishy type of a lineup, type of a team. Later on, they can have amazing team fights. Early on, they can have these skirmishes if they have nasty brood mothers and whatnot. Maybe that's a little bit of a difference. Thunder Awaken definitely striking as a little bit more precise in these early engagements. Also, Bloodseeker, by the way, we mentioned that the hero is great versus Pango, right, in a game such as that one versus Nyx. But just the fact that they got their Bloodseeker was even better. It's full comfort zone for Thunder Awaken. No, for sure. It's complete comfort zone. And it's always Picard who really gets the last, pick. They really focus around, is he comfortable? I mean, he's a record breaker. Like, he's literally like most average kills in games, highest GPMs. Like, you'd want to give this player those just kind of priority in the draft, at least. Yeah, I think we might even have some information on Picaz, if we have to see. We were a little bit more suspenseful with getting into game 2, even though the players were back on stage. I do believe there was a headset change, so it gives everyone a little bit more time to kind of relax and come down. So quite happy about that. But it looks like we are going to be heading over and ready to go into game 2. We head over to the Voice of God, and then we're coming back. Team Liquid versus Thunder Awaken. Game 2. Have they reset? Have they calmed down? I saw Blitz As you giggling. mentioned, sorry, go on. No, I saw Blitz giggling. He looked happy. Really? All right. But I think, was it T or Lizard, one of you mentioned they just have to just go in and be logical again. Get rid of the emotions and just focus on the bans and picks. Yeah, that's kind of the thing in tournaments. A lot of people, when they're watching at home, they just assume that every game is just about, oh, you lost this game, let's just blame the draft. They go to game 2, changes. Like, Dota is such a game about the people you're playing it with and how you're approaching. I think, of course, OG just clearly showed that in previous TIs, and Spirit as well in their TI run. Like, TI as a tournament is so different to anything else, and of course Liquid, because they've played the last chance, the groups, and they get here. A loss like this, surely it's something that you can laugh about, as you see Blitz being a bit more casual. He's taking off the jacket again. Taking off the jacket. It just got serious. Yeah, the guns are out. The guns are out, yeah. And Tiny is out as well. Dawnbreaker plus Tiny. This time around, Liquid do not want to snatch that hero. Instead, they just completely eliminated 2 of the most important heroes to eliminate against Thunder Awaken. But you do let the Marcy go through Lashrak, however. Mickey, he literally single-handedly brought that last game back into... Yeah, the mid-game was all about Mid-game was all about him. The Lashrak it was way too much of a problem, in my opinion, and I'm so on board with this ban. I now just want to see how Liquid respond to this Marcy, because other teams have played around with the Lich, some have played around with the Crystal Maiden. We've also seen the Sven with his Warcry giving armor. Like, these 3 supports are the ones that I see the most in response to Marcy. I like the Enigma pickup though. I just think it's so reliable in lane and Tusk, yeah, Tusk. I mean, it's not a defensive way of playing against Marcy, but it's definitely a very offensive lane and a good way to rotate. It's also the big comfort heroes, right? This is Zion, Enigma, Boxy on Tusk. Yeah, completely comfort. Yeah, Boxy's Tusk. Actually, we talk about the early game from Thunder Awaken, but Boxy's Tusk has destroyed some teams' early games. Think about the Entity series the other day. Even though Liquid lost that game, the Clockwork Sniper lane of Entity, it had like 4, 5, if not 6 deaths in laning phase just because of how Boxy was calculating his charge, doing the maths, getting the damage in. Think about this morning's game versus OG. Poor Yuragi went to the jungle 5 minutes in because of Boxy and Broodmother, right? So overall, definitely can have a ton of impact early on. We see the Gyro coming out here on the main stage for the 2nd time today. So taking a page out of Aster's book. Another answer to the Enigma in the laning stage, right? But I'm wondering, like, we did witness a Rubik in that last game. Is that something that's possible here? Because Tusk can be a little bit scary, right? Like, he gets on top of you, eliminates you, but you are playing into an Enigma. Stealing that black hole could come in handy. Yeah, I think it's one of those things where Rubik's still prevalent, Silence is still decent. The bans right now from Liquid, they're respecting the big picture of Thunder Awaken, but they might have to consider some type of ban to potentially cover this. I think Matthew is the one that prefers playing Marcy on their team. Otherwise, we could have seen something like a Nyx as well, which it didn't get banned this game. But looking at Pandas,
hero pool. He has really enjoyed the Crystal Maiden. It might just be that they pull that out again because he plays, we've talked about it in previous panels, he loves save heroes, and if he's not playing save this tournament, he's been playing Crystal Maiden. Yeah, one hero that got banned out versus the Enigma last game, it was because of Insania, but Winter Wyvern got banned out. Is that something that Panda can play as well? Panda can, yeah. Decent versus Enigma can fly over the shards as well. He actually has a very long relationship with Winter Wyvern. He used to play it, but like the pressure of getting the good ults off, yeah, it was too much. So he actually just completely stopped playing it for a really long time. That pressure gets to all of us. And he's not played it at TI, but this is a decent game for it. I was going to say, he finally got over that and started playing it again back towards the later end of this year, and it is something in his repertoire now. Toxic relationship. I mean, my God, my boy. I mean, I want him to play to his comfort, though. I think if it's something like, I don't want that doubt to kind of creep in of like, can I play this here? It's okay, so they're switching things up a little bit here. Enigma, I was thinking about this. We saw Tusk and Brood in the morning. We were gonna see it again. And what is this? Enigma 5, right? Like, do you rotate it to a 5? That's the reason why. Gyrocopter earlier today, we saw the Enigma into the Gyrocopter into Enigma lane because of course, the flat cannon killing off the Eidolons. Pakaz is the player that's played it the most times. This is now his third Gyrocopter game and 6 so far at this TI. He's the one that popularized this hero for other teams to copy. And yeah, Liquid, they're like, okay, let's put the Enigma down, a couple slots, pick Brood. Maybe if you're Thunder Awaken, this Gyrocopter also gets potentially demoted a little bit in regards to support. That's what worries me, right? Keep fighting the flexibility. I want Panda to be on his comfort. I don't want him to be shoved on a Gyrocopter that he doesn't feel good on. Do you actually think that it needs to be relegated? It doesn't need to be. Yeah, can't you just go the same way OG did it, but maybe a little bit more precise with the Snapfire here? You pick it up. You have a way to get over the shards with the gyro, and you actually are strong enough to match up in that lane. As long as that position 5 provides kill threat on the spiders when Brood hits 6, so then gyro plus this 5 can just hold hands the entire time throughout laning phase, and then that kind of post-laning phase window where Brood tries to take your tower, I think they'll be in a pretty decent spot to take a fight with this. Both hands as in IO? Probably not happening, right? They go with the Disruptor instead. It's going to be an aggressive lane. Like, this is going to be, when they enter this, we Thunder Strikes, missiles, just really trying to get this Brood a little bit out of lane early on. Yeah, we just spam her right in the lane. And the only thing I'm looking at, though, is you have no one that holds the lane later down the line, and some teams have completely ignored this aspect of Brood, but it always has these downsides. You can pick heroes that fight and don't care about Brood and just try and take the fight to the other places of the map, but she will take your tier 2 for free if you do that, and when you lose that, your map becomes smaller and smaller and your net worth really starts to shrink. Well, they get that extra wall, that extra protection in the Tidehunter that you can actually position against the Brood in any lane, post-laning stage. He's just going to sit his watermelon-y ass in front of the Brood and defend the tower forever. Amen to that. 10 seconds. There is obviously slight problems with that he's also your key team fight component, and you want to be able to bring him to your fights. So if he leaves that lane at all to go for a smoke move, Brood's just going to pressure tier 2 tower, and he can't defend every tower, everything, and do all the fights at the same time. So it is a lot of burden on his shoulders. And you as well, like Tide, it gives you stun, but he's not a lot of damage. Right now, like Gyro needs a lot of items to have a lot of damage as well, and Broodmother is going to rush this Wraith pack that she's going to have around 13 to 15 minutes, and that's going to reduce everything. Yeah, Ursa was an option, an obvious one as well, right? Like a hero that can get on top of the Gyro later on, but also a hero that can deal with Tidehunter. Secret's response as well, when Sacred played the Tidehunter in the upper bracket, it was against his Ursa lane. It didn't do too well in regards to the game, and this is going to be Liquid's response. When you have Broodmother in one lane forcing heroes to rotate there, Enigma sacrificing top lane to keep Ursa at a healthy position, the farm will naturally come to Liquid's side. So it's more on Thunder Awaken, how are they going to make these early game shifts in their hero placement to be able to offset what should be a very kind of playing itself style of laning setup that Liquid have right now. And when it comes to the last picks, we're looking at the mid laners, right? Yeah, super active requirement for Thunder Awaken's last pick. Dark Margot needs to be on this like super high damagey style hero to just connect the dots right now between their heroes. They have initiation with Marcy, they have kind of team fight protection with Tidehunter, but they just need that extra little bit of something to put fear into Liquid's kind of early aggression. Is Puck too weak of an active hero just because of the spell damage? It's not enough damage, I think. It's still solid a bit with the Gyro, right? Like it could work, but also teams do like to get on top of Brood easily, and Storm Spirits are
I'd say Batrider might need to be considered a little bit here. Damn, yeah. Some Batrider Thunder Awaken BKB, you just rotate to side lanes, and it just could complicate the game. With the quad being banned out, that's probably what's on Blitz's mind as well, right? Like quad being banned out, Batrider instantly comes into one of the possibilities. But if Bat gets picked up, then you can go with the Storm perhaps for Liquid. That's an option. One of the ways to deal with the Bat in the laning stage and later on as well. Yeah, I don't need a team, like I don't need someone that makes plays on Thunder's lineup right now. I just need someone that can hold the tower fight. Like if Liquid want to come mid and push, for example, I want them to be able to fight around it. I just need damage. Like I'm so concerned about this Wraith Pack timing on Brood. That was bad. Ban the Batrider. I mean, maybe they could opt for like a Kunkka or something, and he goes for this physical damage build. It's really the options are much less because Thunder also banned out a lot of the heroes that just go with the Spirits. I feel like Spirits are always your safest choice. Like they give you a little bit of everything, and you can defend the towers perhaps with the Tidehunter standing in front of them, and then Ember is the one that will bring the damage and also gives you that ability to breach the backlines, get on top of Brood. I'm trying to think of the Liquid last pick now. 5 seconds remaining. Well, they have Ursa, who's going to match up well into Gyro, deal with Titan lane. Ember, I guess they're lacking lockdown outside of the black hole, so maybe just something with a little extra catch. They could go Who do you guys prefer draft-wise? So far, I know it's not finished, but like, do you feel comfortable for Team Liquid going into, their elimination match? I feel like their draft is a little wonkier, just off of that Enigma being a position 5, most likely being the position 5. They go with the puck. Choose your hero. Nice. They have a lot of lockdown now. They needed a way to basically, to Thunder Awaken, they picked this Ember Spirit because if Tide has a bad lane, you need an extra core to help poke in these earlier fights, and they want to bring numbers. Ursa needs more time to come online. So. No, sorry to interrupt you. Oh, no worries. No, it's okay. The players are ready. This could be Team Liquid eliminated. Let's check in with Thunder Awaken as we go to Avo for a pre-match interview. I'm here with the coach from Thunder, Vintage. Vintage, sé que anteriormente ustedes confiaban mucho en el Morphling de Pacas. ¿El Gyrocopter está al mismo nivel? ¿Hay pura fe en ese Gyrocopter? Actualmente tenemos 100% win rate con Gyro, así que esperamos no perder la racha hoy. He says, actually, right now we have 100% win rate with Gyrocopter, so it's going to be good for our streak today. Now, one final scream for the Thunder Boys. How can people in the audience support you? Perdón. Un grito final para los chicos. Un grito final para los chicos. ¿Cómo te pueden apoyar la gente del público, amigo? Respeten esa mierda. Respect SA, you shits. That's what he said. Absolutely wonderful. Fighting words going into a game 2, very much deserved after that performance in game 1. Absolutely. Because Mega Creep comebacks on the main stage, right? EG versus eHome, Secret versus Mineski. Now we have Liquid versus Thunder Awaken. It's got to take some serious mental resilience to come back after a Mega Creep comeback like that and lose. If you're Liquid, it's going to take a whole lot. Meanwhile, Thunder are going to be feeling themselves, right? I mean, this is a test of team fortitude right here. There's no other way around it. Liquid has... Some of these guys were denied TI last year. They come in this year. They're on the ropes in LCQ. They make it through those groups in pretty good position. They go through this bracket. They're in the lower bracket. They're on the brink of elimination so many times, and yet they are still here for a reason. The mental fortitude of this team is out of control. And on the flip side, Thunder, they are looking for the highest position ever for an SA team. That is why they want that respect. This is 11 years in the making for this game right here of SA Dota getting to this point. Can they push their ticket? Or are we going to go to game 3 where Liquid will test them? 30 seconds. Looks like more team fight is in store because once again, Tidehunter Enigma would not be a TI game without the big boys. We're going to have the big team. तो चलिए चलते हैं हमारे BO3 सीरीज के दूसरे गेम की तरफ, Thunder Awaken versus Team Liquid. And once again we have with us, ladies and gentlemen, Mr. Arrow, joined by Krat and Fixes. पता नहीं Fixes देख नहीं रहा. Fixes यार आपके अंदर बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है क्या? मतलब what is this? मैं तो आपके जान के बहुत करीब हूँ Krat. दिल कहाँ के करीब? जान.
He's close to your life. Jaan. Doesn't make sense in Hindi, but I don't know. ये English ओडिशा से What a थोड़ा good मामला block tight by है. Puck. But it's Ember versus Puck. Obviously बात है Ember की skill build के अंदर start off phase थोड़ा होगा. But यार recently there was a time Ember पे third skill max होती थी flame guard. उसके बाद अब start off phase max होने लगी. अब searing chain max करके घूमते लोग. Yeah bro. मैंने कल परसों ये line notice किया था. अच्छा विशाल ने कंसेंसस दी है कि ये गेम 2-0 खत्म होगा. सो विशाल नहीं, that was before Puck. तो अभी कुछ बोल नहीं सकते. आज के दिन हमने एक पक देखा है, that was not a good game. Not nice. हाँ मतलब ठीक है. The thing is कि these guys have Ember, and how do you counter Ember if Puck probably. So अभी Ember force हो जाएगा BKB बनाने पे. Gyrocopter not good against Puck. जी. फिक्सर्स आपका क्या कहना है इस गेम के बारे में? आई थिंक टीम लिक्विड ने पिछले मैच में जो उनको करारी मात मिली है जी, जीत के काफ़ी करीब चले गए थे, तो दिस इज देम गोइंग ऑल आउट, क्योंकि बैटल है टिल सर्वाइवल एंड वी हैव सीन ज़ाई बीइंग प्रीटी कंसिस्टेंट ब्रूड मदर के साथ काफ़ी अच्छा खेले. अगर टीम कॉम्पोजिशंस की बात करें तो आई थिंक अर्ली ऑन आई रियली वांट टू सी टंड्रा ट्राइंग टू गेट सम वैल्यू आउट एंड because look at Liquid's drafting compositions, right? आपके पास टस्क है, टस्क अर्सा को अगर स्नोबॉल करवा के लेके जाते हैं, Puck has that dream coil lineup followed up by a black, you know, the black hole. So that is where things go awry. And plus you can easily deal with the backline supports with Zai. So I really like both the teams right now. I just want to see a good game of Dota. Definitely it looks like कि अच्छा गेम होने वाला है, but it is going to be dead for the next 4-5 minutes or so because लोगों को online आना है, so they need to farm for sure. Titantel is not good against Ursa for sure. Once again, जो Fury swipes होते हैं they stack and Ursa can probably have an advantage, but that's the reason डिसरप्टर को उन्होंने उर्सा के साथ रखा है कि हैरस कर पाए a little bit and yeah, let's see how it goes. Mid lane again evenly matched up. Surprisingly Ember has a edge here because I think Puck ने काफ़ी टाइम वेस्ट किया अपना Ember को फिजिकल डैमेज देने के लिए. What's interesting is Disruptor, okay, they're going on Gyro. Gyro बहुत ही ज़्यादा करीब थे यहाँ पे फर्स्ट ब्लड का शिकार बनने के, बट that was a good save from Marcy. बट ऊपर टॉप लेन में मटुम्बा मैन बहुत ज़्यादा लो ले जा चुके हैं इनको, और अभी भी सेक्रेड ही बट नहीं पैंडमू को वो पहला फर्स्ट ब्लड जाता हुआ. Yes, Thunder Awaken on a lead. Oh, that's going to be the second. What a save. Nice save. Nice save. I'm really surprised though, like यहाँ पे Enigma को they've kept as a P4. And Yeah, so Enigma is usually position 3 or 4. It makes sense to have Brood as 3. So 4 is the ideal way. So that and plus top lane, so that जो carry का tower है and Ursa के लिए space बनाए, तो Enigma should be able to help to get the top tier 1. I think they can focus on getting a few for Thunder Awakening post-ups. Early हम लोग शायद देख सकते हैं काफी सारे coming out from the players. I think Matu is dead. Matu एक और shot. He might be Yes, one for the oh, salve. What a salve. Nice salve just to stay alive. I don't think यहाँ से over aggress करना चाहेंगे Sacred. But that is expensive, you know. Yeah. कि salve use कर लिया, consumables नहीं है अभी, so he will have to borrow it from Enigma. But Enigma के पास भी नहीं होगा because no Enigma comes with consumables. They just bring mana. So Brood Mother expecting कि बहुत ज़्यादा फार्म हो जाए लेन पर and at the same time Gyrocopter को भी काफ़ी harass कर पाएगी alongside Tusk. They're going on Mars. They're going on Gyrocopter. 2-man stun.
Yeah, good turnout in Good their save favor, from but Marty. I think good save. And at this moment, I think Team Thunder Awakening have done a really good decent Ember job. is here. Yeah. Oh. Brute should be dead. Yeah, double. Oh, उसको सीलिंग चेंज नहीं लगी है, so he should be fine. Mother of spiders is okay. I also thought वहाँ पे double की possibility थी, but mother surviving एक नुकसान होने से बचाया. Yes. Wards are out. Let's see where the next ward placement will be. I don't know यहाँ पे win conditions क्या रहेंगी for Thunder, Awaken and Liquid. So it is right now equally matched. Yeah. But let's see. I think that draft wise, it should be. ब्लैक होल पे वो था ना यार, कोई फॉलो अप नहीं दिख रहा मुझे. करेंगे क्या लोग? It should be Thunder. टाइड हंटर पे एटलीस्ट स्टैटिक स्टॉर्म है, कॉल डाउन है, ऊपर से स्लाइट ऑफ फेस वगैरह भी आ गया तो काम बन सकता है. बट इट डिपेंड जब ये एम्बर भी कौन से वाला खेलेंगे, ये मेल स्टॉर्म सेप्टर वाला खेलेंगे या बैटल फ्यूरी डेडलेस वाला खेलेंगे. और डिपेंड भी करता है कि पक कितना स्नोबॉल कर पाती है. So अभी तक तो कुछ नहीं है. बहुत टाइम हो गया ना यार पक का वो कहते ना डेडली डोमिनेशन देखे हुए. इस बार ज़्यादा हम लोग को पक पिक्स बहुत रेयरली सिचुएशनल पिक्स ही देखे हैं. लाइक इट्स been more about those standard mid lanes, either Ember जा रहा है या फिर you're picking up a Lesh. लीना भी कुछ occasions पे. हाँ, most of the occasions. मतलब Mars. ये मतलब जो एक इंटरनेशनल से पहले एक अपडेट आता है. अपडेट में कम से कम 10-15 हीरो हाईलाइटेड होते हैं और फिर उसी से खिचड़ी बनना चालू होती है. Actually, in my experience, it's more about कि कौन से इवेंट में क्या मोस्टली पिक हो रहा है एंड देन वो उसका ट्रेंड बन जाता है. अब कोई ना कोई तो इसको रिड्यूस करता होगा ना. जैसे पफी यूज्ड टू बी द पहला बंदा जो पहले पूरा जो पैच को डिकोड करता था, फिर वो जो यूज करता था. Good gang. Puck is here and Ember is also here, so this should go to. Ember is not doing anything because यहाँ पे वो illusion ऑफ मार के पक आउट करके निकल जाएगी और ब्रूट को कैच करना इज नॉट पॉसिबल. रोटेशन थोड़ी वेस्ट होगी, बट ऑल्दो द गुड पार्ट इज कि पक को फायदा हुआ थोड़ा सा. They got one. अब मुझे देखना है कि ऊपर भी मुठभेड़ चल रही है. Oh, nice one. There was some damage. Oh, going on Gyro. Ember यहाँ पे मौजूद. Gyro इससे पहले कुछ कर पाए. He gets taken out. They should fight. And yeah, there you go. पकड़े तो जाएंगे. उनके पास बॉटल आ जाएगी. ऊपर भी अर्सा और टाइड हंटर के अंदर एक बहुत बड़ी एम्बुश चल रही है, बट वो टावर पे भी टैंक करते जा रहे हैं. Oh my God, Martu, are you for real? He got dead. Oh. And this is some tier 1 Dota. Just going back in. He's dead. DK इकलौते players in the end. Oh, Dark Mago still alive, but this time I think he might go falling down. No mana, no HP. Yeah. Fine. Nothing at all. Fine. But तब तक तो Puck might die. What is Gyro is back. What is happening? Puck तो नहीं मरती, you know that. पक्का. Oh, फिर से ड्रीम को ये मतलब 1 मिनट से यहीं पे कंटिन्यूअस एम्बुश चल रहा है. वॉल ऑफ बर्लिन सा बना दिया इन्होंने. एंड जाई ने खड़े यहाँ पर अल्ट्रा किल कलेक्ट करा है. ओह माय गॉड डूड. सो या मैं यही बोल रहा था कि जो व्हेन यू आस्क्ड कि व्हाट इज द प्रेडिक्शन जॉनी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट पक स्टार्ट्स टू स्नोबॉल एंड यू हैव सीन कि व्हाट अ पक कैन डू. सो शी विल बेसिकली ड्राइव कि आगे क्या होने वाला है पूरे गेम में. I think जैसा क्रैट थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पक का डोमिनेशन नहीं देखा. I think इस गेम में क्रैट देखने को मिल सकता है. Are you hopeful? पक के अब वो जो पब पक्स होती है, वो डेसो वो क्या बनाती है, वो विच ब्लेड, डेगन, डेसो वगैरह वैसा तो होने से रहा. बट यहाँ पर टीम गेम के अंदर पक डोमिनेशन बहुत कम देखने को मिलती है अनटिल अनलेस वो 1v1 स्टेटस में हार जाए. बट यहाँ पे मैथ्यू पे चेस करने की कोशिश, ब्रूट मतलब फुल पावर घुसने की कोशिश. मुझे नहीं लगता कि मैथ्यू को बचाना यहाँ पे पॉसिबल होगा. एंड फ्यू मोर सेकंड्स दिस ऑन हिज सोल विल बी डेड. लिक्विड जाई इज ऑन अ रोल. जाई को भी अल्ट्रा किल मिली. एक और किल यहाँ पे उठा लिया नेटवर्क के अंदर. ही इज ऑन द टॉप फॉलोड बाय हिज अलाइड मिड पार्टनर पक. एंड अभी अपनी मार्टुम्बा का हमने थ्रो गेम पे भी देख लिया था. एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय टू द पानामुटू बिकॉज एक बार आप आई शॉट में फंस जाते हैं. टस्क की बहुत ज़्यादा पिक हुआ है. जब से एक नया स्किल ऐड हुआ है ना इसमें टैग टीम, वो जो डैमेज इज इमेंस. मतलब अच्छे लोगों को भूत उतार सकता है उस टाइम पे. राइट. बट अभी मतलब
Buck और Brood Mother इतना ज़्यादा farm हो चुके हैं कि things are going a little out of hand because once you get those blinks online, Puck का जो विशाल कह रहे थे वो snowballing वाला factor काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा. He'll be all over the place, and we know his at least farm potential. Illusory or use the Pixie does like just get as much farm, lanes clear करते रहेंगे, and he keeps on getting more dangerous. And in a clear contrast to the Ember right now, his counterpart almost 1000 gold की lead पे जा चुके हैं. So you know this is what concerning. fixes? Yeah. They can go and do Roshan right now. Yeah, they definitely can. With Ursa there, with all the brood With links. Ursa, Enigma and Brood Mother. Oh, but this is an initiation again. Dark Mago को shut down किया गया है. Just the kinetic field to zone them out. Haven't seen a lot out of Sacred right now. Maybe wants to get his lads up. Ravage finally coming out and shut down यहाँ पे. But PK has just backed off a little bit. And Zai doing his thing. सीधा जाके tower मार रहा है. Because he knows कि if he goes to Tidehunter, he's just gonna gush them out. Yep. Well aware of their objectives. और पकास ने लेन चेंज कर दिया. देखा कि बॉट लेन पे इतनी भसड़ हुई. Smoke to try to kill Ursa. Yeah. Tusker बैठा है. And there's one more TP. We might see a black hole here. But Ursa goes down. TP cancelled. The tower potentially. They should get this tower for sure because they're going to lose more in terms of Brood Mother comparison. Objectives versus kills. Just wanting to secure that rune and bottom पे spawn हो गया sadly. And this Puck should die. And now Thunder Awakening completely just getting back into the game. So I think that was a very well initiated smoke gang created down on top because वहाँ पे static field का इस्तेमाल करना was clearly enabling कि वहाँ पे कोई गुंजाइश ना रखे, cannot give access to that snowball और बचा के रखे. And oh, that's a lot of gold. So काफ़ी दिक्कतें होने वाली है उर्सा के लिए क्योंकि he will have to think कि मैं मारूँ तो किसको मारूँ, right? Gyrocopter और Tidehunter और Ember Spirit. So I believe that Ember Spirit को usually Brood Mother will take care of Ember Spirit, but he will have he will be in the dilemma कि मैं किसको मारूँ, Ursa basically. But then you also have Puck, so the game is currently evenly matched. But the tower advantage it goes to Liquid. Radiant's bottom tower has fallen. 100% win rate. Two-man smoke, Tusker and Puck. Let's see what. Alright, so Insania failed black hole और इसका यहाँ पे भारी नुकसान हो सकता है. Kinetic Storm into the static field. Marcy को जरूर गवाया, but the follow-up is definitely there. Call down आ चुका है, and there goes Insania falling down. दो और players यहाँ पे जाने वाले हैं, and Matu will be that big pick. अगर एक glimpse यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते, वापस बुलाया जाएगा, but उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं. लक्ष्मी चिट फंड चल रहा है, एक का ट्रिपल. You lose one, you get 3. Insania अपने आप को कोस रहे होंगे इस समय. And Zai doing his thing. Zai doing Zai. अभी I think जितना Team Liquid strong लग रही थी game के early stages में, Thunder Awaken has managed to turn all of it around. Zai इस लड़ाई का हिस्सा बनने की कोशिश करते हुए, but पीछे से ये Tidehunter आके काफी ज़्यादा परेशान करने वाले. 3 players Team Liquid के अब जुड़ते हुए Tidehunter के ऊपर काफी ज़्यादा बड़ा आक्रमण हो चुका है. इससे बच के निकलना तो मुश्किल होने वाला है. He's trying his level best to survive. The Puck is here as well, and Zai पीछे से चेस करते हुए नजर आ रहा है. Sacred ने बहुत देर तक टैंक किया, but लिमिट होती है हर चीज की. So जो थोड़ा सा एडवांटेज गेन किया था Thunder ने, it has gone back now. And वो लोग अभी रोश कर actually कर रहे हैं. This should be a quick rush. And now they don't want him to take the. Then they push mid tower. Yeah. Or top tower. देखिए फिर से थोड़ी दिक्कतों में मार्सी थी. She just sleeps away. Snowball करते हुए काफ़ी अच्छे पोजीशन पे आ गए, but no, they want to catch Insania. अभी just black hole use किया था, so definitely not online anymore. And so the idea was to get Drosh. Not let Gyro farm the neutral camps. Okay. Oh. So they were able to block it, and Rosh भी मिल गया to Ursa. Now
वो फ्री घूम सकता है कि he has another life. What is Insania playing? Enigma. And he is position 3-man smoke Insania's position and 4. some watermelon. अभी के लिए तो I think they would be having him on position 4. अगर Enigma नहीं, it's not possible man. Insania's position 5. And I just noticed कि मुझे लगा कि Enigma और वो भी Insania भाई क्या ही होने वाला है, मतलब बस ब्लैक होल के है वो प्लेयर. Yes, beautiful black hole जिसमें कोई नहीं था last time, but let's see what he can do. वरना वो जायरो पिक कर लेगा जैसे 2018 में. Matu just wasting his time. He could do better things with that farm. Anchor Smash 4 level का है और Gush 2 level का, Kraken Chun 3 level का. और I don't know why people don't complete BOTs or just phase boots with Ember. You know, phase boots के साथ अच्छा खासा डैमेज हो जाता है. प्लस आपके पास corrosion orb है, प्लस maelstrom, मतलब हर एक sleight of fist बहुत ज़्यादा डैमेज देता है. It looks like कि Tide will go for a scepter build. हाँ, that I know that. इतना AoE में जाता है पूरा. और आर्मर वगैरह जो क्रैश होता है वो ज़्यादा अमेजिंग होता है. I don't enjoy watching this Ember ये Maelstrom वाला. वो जो पुराना Ember होता था ना Battle Fury जिसके अंदर वो क्लीव लगती भी जाती थी लोगों को. वो भाई मतलब. So it actually makes sense because इतने सारे units हैं. But yes, a Battle Fury build was also good. Yes. Pure damage, right? मतलब कुछ That नहीं करना. was more time taking ना. Like Battle Fury बनाना. हाँ. And also you don't have defense, right? So. एक Lincoln होता है या तो एक यूज सेप्टर, एक लिंक और 3 डैमेज आइटम, डेस्टो, डेडलेस और डिवाइन. आपको कुछ नहीं करना, एक रेमनेंट छोड़ना है, ब्लिंकिन, स्लाइट ऑफ फेस और वॉटर. काम हो जाता है. यहाँ पे पड़ा है दूसरा किसी का और Insania is caught with, no, it was gyrocopter and it was एक मेरी भगत थी और रैबिट कनेक्ट करा मटुम्बा मैन को एंड स्टैटिक स्टॉर्म से उनका स्वागत किया है. He stuck on the parameters of that kinetic field. बाहर नहीं जा पाएंगे बट इट्स नॉट सो इजी टू किल दिस फैट मटुम्बा मैन. एजेस भले चले जाए बट वंस ही विल ओह अभी भी नहीं मरे, कुछ भी करके टिके हुए. उन्होंने अपनी अल्टीमेट कमिट कर दी एंड बिफोर गोइंग डाउन ही गॉट एम्बर 2. हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे. और एजेस के बाद फाइनली ब्रांड न्यू अरसा बाहर आएंगे एंड ये हुआ बात. और ब्लैक होल के बाद they secured 4 finishes, 4 kills. और gyrocopter भी अब अभी रिस्पॉन्ड कर गए हैं. डिसरप्टर उनके साथ है बट उनके पास अल्टीमेट तो होगा नहीं बिकॉज अभी हमने देखा था अर्सा को मारी थी अब. और स्कोर लाइन है 18-14 एंड जो एडवांटेज है 6k का ऑलरेडी हो चुका है. जस्ट राइट साइड देखिए सर आपके रिमोट वहाँ पर. It's like one of the moments जब हम सोचते हैं ना लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा. थंडर के साथ वही हुआ है. Back to back mistakes. Gyro died again. Why would you TP there? Or like is that a replay? It's a replay. Yeah. So they did not had any damage to dish out. And फिर इसको What else you can do? You know there were 2 Radiants there. Mercy बाद में आई है. Tidehunter ने डैमेज मार दी. Anchor Smash मार दिया. माना है नहीं. Static Storm और Thunder Strike के बाद अब बेचारा ये भी क्या करेगा? And then coil लगी हुई है. हाँ. So poor souls couldn't do much. And I was looking at the stats, Vishal Gupta, and you will be very, happy to, the hardest carry in the game, Medusa. Hardest carry in the game. The dead hard, मतलब एक बार 60-70 मिनट हो जाए तो एक बार जो AFK एंशिएंट की तरह खड़ी हो जाती है जो, जैसा नो, वो अभी तक इस गेम में पिक नहीं हुई पूरे टूर्नामेंट में इंटरनेशनल में. एंटीमेज नो, स्लिंक्स नो, डीके नो, मीपो नो, नेक्रो, टिंकर, टेकीज, रेत किंग. इस बार लिटरली ऊपर के 4-5 प्लेयर्स पिक हुए हैं जिसके अंदर ये है क्रिस्टियन मेटन, लेस्टैक, टाइनी, मर्सी, स्नैपअप, एंगोस, शैडोफिन एंड लाइफ स्टीलर, लिच, मार्स, ये कुछ. बाकी सब का 1-1, 2-2, 3 दिन गेम. आई थिंक वो इसलिए है क्योंकि करंट टूर्नामेंट्स में जो टेम्पो है गेम का इट इज़ वेरी फास्ट एंड हीरोज लाइक अ मेड्यूसा और अ व्रेथ किंग आर टू स्लो टू कम ऑनलाइन, टू स्लो टू मेक एनी एक्शंस. तो काफ़ी दिक्कतें होती है एंड तुम काइंड ऑफ 4-on-5 खेलने लगते हो राइट फॉर फर्स्ट 20-25 मिनट्स. Tinker? What about Tinker? Nothing to say is the best Tinker in the world. Squishy, right? When you have an option like Ember or Alina, why would you go for Tinker? But when you know that अगर वो Tinker पनप जाए, अब तो BOTs की भी ज़रूरत नहीं है. आपको करना क्या है? I think that if आगे अगर अच्छी टीम हो तो catching a Tinker is not that hard. I
Yeah, no doubt. एक बार पकड़ा जाए अब तो do you know the recent update of the Tinker? No. If I'm rearming and you stun me, rearm will get 7-second cooldown. What? रियाम पे कूलडाउन डाल दिया सालों ने पहले मार्च मशीन हटाया उसके बाद उन्होंने रियाम भी खराब कर दिया अब क्या होगा Can you have your answer? Definitely no. Never mind, it's okay. Enigma Zai playing Brood Mother और पक के पास विचब्लेड आ चुका है साथ में ब्लिंक डैगर भी है but I don't like pucks without huge scepter. So she is going for Kaya and Sage, which will provide Puck extra status assistance so that she the amount of disable she will be getting it will be minimized. and also Sage. Just because of Sage only. Kaya तो उसका बस mana pool का वो requirement कम So करेगी. Sage का भी proc होता है, right? It slows you Oh yes, with the Witchblade too. with the Witchblade. I get it. I get it. Thank you so much. It's a nice guy you are, but यहाँ पे I don't know what he's trying to do here. Tusk, Boxy is always a overcommitter. हमेशा limitations को push करते हुए दिखते हैं, and usually अकेले दिखते हैं. अगर एक आधा player अपने साथ लेकर जाएंगे तो शायद से कुछ और फायदा निकाल सकते हैं. But game थोड़ा stuck सा हो गया. 10,000 का नेटवर्थ है यहाँ पे Liquid के पास, and they are not doing anything. Maybe just waiting for the next set of items. अगर नेटवर्थ की बात करें तो सबसे ऊपर अभी भी रेडियंट के ही कैरी हैं और उसके बाद लगातार 3 कोर्स हैं यहाँ पे लिक्विड के और वॉर्ड गेम और एक बार वॉर्ड देखो यार मतलब डायर जंगल में कुछ नहीं है नोबडी इज फार्मिंग एंड पूरा इंटरेस्ट इस वक्त रिवर और सदर्न साइड पे Yes, so Thunder has gone for defensive ward because they want Ember और Gyro के पास Wiki भी आ जाए. That's why they want Vision में रहे वो हाँ Vision में रहे and farm करे अपना because once they get their BKBs उसकी बाद की fight will be the decider for the next 10 minutes who's gonna lead. Specialist array. I was talking about this neutral item. You know, 2 फट के निकलते हैं एक कूलडाउन के बाद सोच के देख. What is the cooldown? मेरे ख्याल से एक 7-8. Silver Edge and एक SF is fat and you using this item and 2 निकले एक साथ. उसमें क्रिट निकल के तो सपोर्ट गाया. Is it only for range? No. I think it's for range. Yeah. उसमें लिखा हुआ है. But अगर मीली होगा तो इको सेवर ही हो जाएगा. क्या है ना थोड़ा सा अधिक था. I don't know exactly but मैंने मैं वही सोच रहा था if you are Slardar you get eco saber in this side. But ये tier 3 आइटम है यार 22 tier 2 और tier 3 में आता है तो 22 मिनट से पहले क्या ही इतना होगा. But it's a nice item because attributes वगैरह मिलते हैं. You get 5 attributes and 10 damage too. So I think ये smoke spotted है by the Radiance. Yeah. The dives. और Radiance smoke करके Radiant के जंगल में घूम रहे हैं. ये एक अलग ही alcoholic गेम प्ले है यहाँ पर हमारी टीम का. ये खौफ है. ये कितनी देर से कुछ यहीं पे पूरा एक्शन हो रहा था. So like little obvious. Ember is going for the BKB just because of the mobility. And ये देखिए Matuma Man is going for the gang without any mana. मतलब almost एक आधे स्किल का माना एक फ्यूरी साइड पे like empower करने की कोशिश कर सकते हैं. But yes, ये जो लगा है यहाँ पर static storm. It's no scene that this Ember save. Gyro has a good opportunity. Oh my God, that black hole बहुत सारे फिर जहाँ पे ले गए. Insania ने अच्छा ट्राई तो किया है. उसके बाद Ravage ने एक काउंटर पार्ट खेला but 2 लोगों के बाय खा चुके हैं. Mercy and Disruptor. Ember की HP कम है. He will be going towards the base but Zai को माना I don't think it's so easy. बहुत कम HP तो नहीं हुई है. कम HP लूज हुई है और Incendic अब Kinetic Field will be stopping him but वहीं पर Gyrocopter को जो डैमेज है it's too much to handle and in few seconds 2 players from the Liquid 3 players चले जा चुके हैं. अब 2 कोर बचे हैं कोर 1 एंड कोर 2. अब एम्बर काफी कम एचपी में है. स्लाइड ऑफ फिस्ट कनेक्ट करने की कोशिश बट इट्स नॉट दैट इजी जब सामने पक हो. बायबैक की वजह से ज़्यादा प्लेयर दिख रहे हैं यहाँ पर थंडर अवेकन की साइड में बट अगर बायबैक नहीं किया होता तो सेम सिचुएशन के अंदर फंसे हुए थे. बट माय मैन विल बी ओवरवेल्म्ड विद हिज परफॉर्मेंस. बट वहाँ से पीछे से आए हैं लिक्विड मिकी एंड ही गॉट द थंडर डार्क मैगो. ये थोड़ा सा ओवर कमिटमेंट था जब उनके पास एचपी नहीं थी. उस एरिया के अंदर घूमना मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत था. क्या कहते हैं मिस्टर गुप्ता? I still think Liquid is the winner here. Yeah. Because they were able to get 2 buybacks and also kills on puck. थोड़ा फायदा. So yeah, if not winner then equally matched and literally they Thunder को सारी चीजें यूज करनी पड़ी and of course Liquid को भी.
but things like BKB matters a lot at the later stage. So 9-second cooldown now for 2 people in Thunder and 1 person, actually 2 in Liquid as well. So it's, yeah, equally matched. But see, Zai is so tanky. मरने का नाम ही नहीं लेता. Zai took at least 10 seconds there. Kinetic field, बहुत सारी चीजें करी. Glimpse भी उन्होंने survive करा. And at this moment I felt like कि Ember could have saved some bugs अगर वो passive चले जाते. And the next item what I can see on the quick buy list is कोई BKB Orchid. हाँ. अब तो पूरा गेम बदल दिया. पहले होता था ऑर्किड और मेलोवेरेंस, साथ में आपने हाइपरस्टोन ले लिया. अब तो विच ब्लेड भी ऐड हो रहे हैं. वो नहीं, वो क्या होता है, मेज स्लेयर और लाइक टोटली अपोजिट. दैट आई वाज प्लेइंग स्टॉर्म. अब बेसिक अपना ऑर्किड कैसे बनता था, 2 ऑब्लिवियन स्टाफ एंड रेसिपी. मैंने ऑब्लिवियन स्टाफ खरीदा सीधा स्टॉर्म पे. बाद में पता चला वो वॉइड स्टोन एंड समथिंग लाइक दैट उससे बनता है ऑर्किड. इसका शॉट क्या करता है? किसका? उर्सा का शॉट ये है कि जब भी आप फर्स्ट स्किल यूज़ करोगे एम्पावर, उस टाइम पे आपको मतलब एक तरीके से आपकी अल्टी पॉप हो जाएगी, प्रॉक हो जाएगी 1.5-2 सेकंड के लिए फर्स्ट स्किल पे. So Ursa now is an APS. It's time to push me. अगर ये डिस्टेंस क्लोज आउट हो जाए, अगर ये अर्सा कुछ भी करके जायरो के पास पहुंच जाता है, जायरो विल बी डिकैपिटेटेड फॉर श्योर. और जायरो ने बनाया है क्रिस्टलिसिस और क्रिस्टालिस, और उन्होंने डेडलेस की रेसिपी खरीदी है. तो देन यस इट्स ऑब्वियस ही विल बी गोइंग फॉर डेडलेस. Because flag cannon के अंदर you know that deal, double flag cannon and the damage will be immense. They can't handle that so easily. और अब टॉप की तरफ अकेले टाइड हंटर है. he is just farming. It's not टाइड हंटर, it's Puck जो टॉप लेन पुश कर he is coming back. but यहाँ पे फाइट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है. cause Puck can be doing a nice flank और ancient Radiant जो जायरो है, he is, I don't know what Insane is trying to do. Wow. Is it any बुद्धा गार्डन लगा के रखा है कि लिटरली चले जा रहे हैं. वो लिटरली रॉकेट बराज को टैंक करते हुए गए हैं. जस्ट वैनिश. इट्स जस्ट अबाउट 40 सेकंड्स ऑल दो, बट इट्स स्टिल 3.5 मिनट है हमारे पास अभी भी अर्सा के पास. एजेस को यूटिलाइज कर सकते हैं. आई थिंक लिक्विड विल बी पुटिंग हैंड्स इन टू गो फॉर फाइट, बिकॉज एजेस का यूटिलाइजेशन तो जरूर बनता है. So that's the power of high ground advantage. You don't have any vision. You don't know what's coming next. So Enigma को कुछ पता नहीं ऊपर कौन खड़ा है, and by the time I believe that he has clicked somewhere कि उधर जाना है. And I was just checking the items. And suddenly respawn timer आ गया उसके screen पर. So वो हल्की सी स्क्रीन लाल नहीं होती और सीधा ब्लैक एंड व्हाइट. नहीं, they keep it off. Pro players keep it off. अरे आप भी हैं यहाँ पे? अच्छा ठीक है. Keep what off? So when someone is hitting you, तो borders ना red हो जाते हैं. So pro players definitely keeps it off. Disturbance नहीं है. हाँ, because distracting. So Ember Spirit के पास BKB आ चुका है. The next item he's going for is Orchid. Definitely for Puck, I believe. Oh, बच गए. Yeah, I forgot it's Ember Spirit. उन्होंने आई थिंक उनके पास इल्यूजन था. हाँ, उन्होंने इल्यूजन यूज किया. They get a mind breaker, luckily. So Orchid can be skipped, I guess. No, I don't think so. वो 2 सेकंड का साइलेंस से ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ेगा. ये 2 सेकंड भी नहीं होता. It's like it's a hard 1 or 1.5 second. But I'm having high expectations from this gyro now because Scepter, BKB, Deadless. These are enough items. और अगला आइटम उन्होंने जो क्विक बाय में डाल रखा है बटर और एक स्लॉट बचा है वहाँ पे. एक सैटानिक आ जाए तो वारे नहीं आ रहे हैं और टाइम ज़्यादा हुआ भी नहीं है. 30 मिनट के अंदर आइटम प्रोग्रेशंस आर वेरी नाइस. बट आई एम लिटरली वरीड अबाउट एम्बर एंड टाइड जो अभी 5th और 6th पे है. What do you think about Butterfly on gyro? It's a beautiful item. Because Broodmother है and she will try to hit you for sure. But what about the Spiderling? उनके भी अटैक में सो हो. हाँ. तो बट वो तो एक साथ में 10 बार आते हैं. उनका फिर क्या ही फर्क है. एक नहीं तो हिट करेगा कांस्टेंट. मेरे हिसाब से बटर यहाँ पर मोस्टली एवेजन से ज़्यादा आपको एट्रीब्यूट मिल जाएगा. Yeah, but I think वो already BKB बना चुका है. So 2 defensive item butter and BKB doesn't work. Takes up your slot, so might as well make something damaging. अभी फिलहाल मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा. Yes, बताइए. Good morning. मैं बोलना चाहता हूँ खत्म करो. पिछले गेम के अंदर मेरी थंडर अवेकन से उम्मीदें बहुत ज़्यादा है. लास्ट गेम में एक इनक्रेडिबल कमबैक देखा हमने
It wasn't a game of Dota. It was a show from Star Plus. So you supporting the Radiants? I'm always rooting for the underdog. what a deep word from Liquid to spot out कि क्या rotation करने की दिमाग में है Thunder के. अच्छा वो नीचे की साइड. हाँ. ठीक है. Like और वहाँ पे एम्बर को यहाँ पे देख लिया और ग्रीन टच वहाँ पे जा रहे हैं and they got the business done. And BKB used. अब ये है. And BKB used. BKB use हुआ है क्या? हाँ. ठीक है. It's super nice then. Dark Mago. Overconfidence meets demise. ये तो rule है like that. और Matumba do some work right. और Matumba is going for blink. This Tide Hunter has 2 Bracer and 1 Ghost Scepter, 1 Sword Ring. Where are they finding money from? Because Puck के पास completed Octarian है. हाँ जी. Puck के वो remember Puck का 25 level का talent tree 420 gold जो Puck के फटफट आइटम आते थे उस टाइम Puck को मिला था ना साइबरबॉक का उसका गिफ्ट कि उसके 25 लेवल पे टैलेंट ट्री था कि उसका जो गोल्ड पर मिनट था he is going for butterfly. उसे डाला था ना क्विक बाय में ढाला हुआ था भाई. ओके अर्सा एमकेबी बना लेगा. व्हाट अ बिग डील देन. Yeah, but that is a slot waste. Why not? भाई एमकेबी तो पियर्सिंग डैमेज है फटफट पड़ता है ब्रो. एमकेबी इज अ गुड आइटम ऑन अर्सा. अर्सा और एल्स यू विल गो फॉर अबीसल और सैटानिक और समथिंग लाइक दैट. मेरे हिसाब से निकल सकता है. Aghanim's complete for Zai. और वो फ्रीजिंग. Oh wow. This Puck will be, you know, pain and bums for sure. ये Puck मरती नहीं आसानी से. बहुत ज़्यादा constant disable चाहिए और ऊपर से ये वो Yondis भी ले रखा है. बट मैं मिक्की ने जाकर पांडा बू को पिक ऑफ करा. And this fight will be crazy. यहाँ पे साइलेंस करने की कोशिश किया मिक्की को. बट इनसे पक आउट कर वो वहाँ से तो निकल के अभी 5 प्लेयर्स जिंदा है लिक्विड के. And the next thing can be Matumba यहाँ पर चढ़े थे सीक्रेट पे पर इंस्टेंट ही Ghost Scepter पॉप करके he came back. उनको अभी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है बिकॉज यहाँ पर एक 1-0 की एडवांटेज एंड दे वांट टू क्लोज दिस गेम 2-0 एंड जॉनी आल्सो वांट्स दिस. बट अभी नेटवर्क देखा जाए, सब कुछ देखा जाए, सब कुछ काउंटिंग में रखा जाए तो प्रॉब्लम है. लिक्विड थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है अभी. बट व्हाट वाज दैट एम्बर? I think he miscalculated. मैं कौन से रेमिनेंट पे जाऊंगा एंड जाना तिलक ना करता उल्टा मावरिंग पे आगे. एंड यस दैट ब्लैक होल स्टॉप जायरो टू गो बैक टू द बेस. एंड आई थिंक कभी भी एक खबर आ सकती है न्यूज़ जिसके अंदर लिखा होगा कि hey guys we going for the game 3. I think हाँ game 3 हो जाएगा जल्दी. This one should also end quickly. Beautiful. She makes sure कि उसने coil डाला कि उसको चेज ना कर पाए. Liquid playing very well right now. 21,000 का नेट एडवांटेज बिल्डअप होता हुआ. पक जैसा एरो आपने पॉइंट आउट किया था कि स्केलिंग चाहिए क्विकली. आई थिंक इससे ज़्यादा तेज तो कुछ दिख नहीं रहा. I think at this moment they don't even need us. पूरी गाने सबके लिए है. अभी हमें गाने गाने का टाइम आ चुका है. गाना गाएं सर ताकि 2-0 हो जाए. पॉसिबल नहीं है ब्रो. गाना गाने से कुछ नहीं है. देखिए मेरे को टीम लिक्विड का चैंट बोलने में भी मजे आते हैं. लेट्स गो लिक्विड. सुनो. इसके पहले भी लिक्विड मतलब अच्छे खासे फेज में थी फिर भी उन्होंने गेम अपने. You mean Liquid is doing it? They can. They have done this. एक दूसरी मोबा है और टीम लिक्विड की लीग की मैं बात कर रहा हूँ. यस सो मेरे लीग के फेवरेट प्लेयर हैं. ही आल्सो प्लेज फॉर टीम लिक्विड. तो मतलब आप चाहते हो गेम नंबर 3 हो जाए. ऑब्वियसली मजे तो आएंगे. लाइक इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट बट रिस्पॉन भी हो रहे हैं हमारे रोशान भाई साहब. लाइक एरो मी फिक्सन जॉनी यू नो वी मेड द स्टेटमेंट कि यार कितनी मतलब लाइफ में इस इंसान ने कभी किसी को गलत नहीं बोला. लोग इसको जाते हैं, इसको मारते हैं, उसके आइटम छीन लेते हैं. नहीं से कभी तू तड़ाक किया, इसके घर पे आओ कोई खड़े रहो, जब तक हाथ नहीं लगाते कुछ कभी हाथ नहीं उठाते. तो बड़ा जेंटलमैन है. ऊपर से आइटम छीन लेते हैं. अभी देखिए जो हमारे मासूम है सटाने की कोशिश तो अच्छी करे बट रैविज इज was on point but पीछे से मार्सी इज चेजिंग कंटिन्यूअसली इनसेनिया और वो वहाँ पे जू करने की कोशिश तो करे पर ज़्यादा देर की बात नहीं है. बट जकीरो काफ़ी जारो कॉप पे काफ़ी कम एचपी में बचे हुए अभी भी सर्वाइव करे. इट्स अ बिग आस. और मटोमा मैन काफ़ी कम एचपी के अंदर एस्केप करते हुए दिखेंगे. बट डार्क
Margo, I think at any second this person will be brought to earth. And movement speed बहुत कम होती है. जब Ember Spirit की movement speed बहुत कम हो जाती है, maybe whatsoever the reason is, तो Remnant की speed भी बहुत कम हो जाती है. That's the reason. अब Ultra Kill सारी situation अकेले जहाँ पे Gyrocopter बचे हुए हैं और जो Zai हैं हाथ पाँव मुँह धो के उनके पीछे पड़ गए. It's a complete team by, but Pandabu ने कर दिया buyback and he thinks that kinetic field. Oh my God, that skill, and he's going back. That Muhammad Ali punch, and he was into the sky. And I think why they're not going for GG? You can save a lot of time. You guys, but finally Sacred called the GG, and we are going for the game number 3. And let's see who's gonna face Aster in the lower bracket next round. Is it going to be Thunder Awaken or fixes your Orisa Team Liquid? I think Team Liquid ही होगी because when it mattered, इन्होंने काफी कम Martu gained a lot of weight. I like the way कि जिस स्पीड में एम्बर अंदर आया था बीकेबी चालू करके उस स्पीड से जा नहीं पाया. He was slowed down and according to fixes, this guy is Jerex. हाँ. Fair enough. अच्छा नहीं दिख रहा है. According to fixes. Jerex Finland king है bro. Fixes कुछ भी बोले हैं, we have to agree with him. Fixes आप. अभी Fixes ने क्रैट के ऊपर एक लॉयर्ड मोमेंट खेला पता. Okay. वो बहुत ही बढ़िया था ये, लाइक हम वापस जाके सुनाएंगे आपको ब्रॉडकास्ट में. हो गया लाइक ये कैसे चल क्यों रहे हैं ऐसे, मतलब क्या हो गया उनको? मतलब लाइक ब्रो दे आर लाइक प्लेइंग, दिस इज द सेकंड BO3 दे प्लेइंग. उनके बम्स बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैटन आउट हो चुके हैं एंड यू वांट देम टू. और हम जो सुबह से यहाँ पे बैठे 4 BO3 कर रहे हैं. ब्रो वी आर हम बीच में चले जाते हैं. हां, प्लेइंग ऑन अ चेयर विद अ बैक स्ट्रेट. ये 2 सोफा मिला दो चेयर से भी एक करके हम ब्रेक ले रहे हैं. हम लोग थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लेते हैं मैचेस के बीच में. एंड उसके बाद हमें भी पता है कि हम लगातार कितनी देर सीधा बैठे रहते हैं. you आप इसके बाद जिम भी करोगे, मेरे साथ संडे आज छुट्टी है. आज टुडे आई कैन करोगे, स्विमिंग भी करोगे. Yeah, we are like me and Fix are going for swim. ये रेस लगी है. ये कंपटीशन आज अनाउंस हुआ है. F1 की रेस बाद में, इनकी रेस पहले. Yeah, आज today is the race day. US. Yeah, Austin. American Grand Prix. 5 and 6. What we want, we never get there. All right, predictions for next game. Who is going to take the series? Liquid. I want to go with Thunder Awaken, just to make things interesting. I'll go with Liquid. Good. What about you? The asker doesn't give the prediction. No, so but now I'm asking. What is your prediction, Vishal? Vishu bhai. I think highlights देखते हम. Welcome to being a talent. Yes, I think हमें बात करनी पड़ेगी विशाल के लिए. We need to get him more on the desk. So wow, what a fight. यहाँ पर literally एम्बर कुछ नहीं कर पाया. And उसके पास बीके भी डिलीवर नहीं हुआ है, बट उसके कुरियर में था. अरे वो बैठा हुआ था एंड उसके बाद हुआ क्या, आखिर में पक उसको मार के भी चली गई थी. यार इताची ठीक से हाईलाइट काट ले. Okay, let's go. Shout out to Mr. Pars. Yeah, it was like 20 minutes and 35 minutes directly. Yeah. There were good fights. Yeah. So, okay, so stats आ चुके हैं हमारे सामने and it was I have to say it was not a bad game from Thunder Awaken. It was a decent game. अच्छा game. उन्होंने शुरुआत अच्छी करी थी, but जो fall off हुआ और जब Team Liquid ने capitalize किया, that was intense and that was what mattered. It's all about snowballing and the flow. जिस flow में पक था and Broodmother, तो Broodmother is always in a flow, and Zai especially is one of the signature heroes of Zai. So give Liquid these two heroes and they'll beat you in any point of time. विशाल, आप प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं बहुत बड़े, क्या वहाँ से कोई एजिस लेके भाग सकता है? लाइक ऐसा मिशन इम्पॉसिबल स्टाइल, छत से कोई आया, लटका उल्टा, एजिस उठाई, निकल गया वापस. क्या बोल रहे हो आप? That'll be interesting to see. बट चलिए, वहाँ पे भी एनालिसिस चल रहा है इंग्लिश डेस्क पे, उधर चलते हैं, देखते हैं व्हाट डू दे हैव टू से. What do you guys?
when you get puck, you can kind of be everywhere quite quickly and still recover back to your mid lane. And I really feel that Mickey, slowed Thunder Awaken down massively. Yeah, 100%. I really like the puck, and I think Liquid really abused vision that game. They had a lot of really deep invasive wards down that they used, especially in the lanes. Like they would leave them kind of on the corners of lanes and stuff to see where Thunder were moving. So it's not only seeing like, oh, the carry's here, it's seeing what support is hiding behind them waiting, so you know who not to go on. And that was what let them dive so aggressively under these tier 2s and stuff and take the good fights. And it's also on top of that, the fact that Zai with his spiderlings, even if they're not blocking camps, they're still giving indirect vision because like they're not farming here. So then Mickey on his puck, he knows exactly they're not here, so if I want to go make an obnoxious play, I can then maybe go fight in the top side. And we saw a perfect example where Zai would have his spiderlings in the triangle, which then forced Bakaz to go farm a lane, and by going to lane, instantly he TPs and gets the kill. So it's just these beautiful movements between cores indirectly, just unlock Liquid to play a beautiful game too. It was sometimes direct vision as well, right? The spiders just following everyone about, you can't shake them off, you can't kill them fast enough for them to not give vision. Meanwhile, Puck, he was uncontested. Ember was going for an orchid, like they needed extra lockdown. Well, Team Liquid's players certainly played well, but that's not really the storyline that most of us care about, because Blitz gave a speech in Game 1 and it was rubbish. No one won, but he did a speech before Game 2 and it really, I think, secured Liquid their victory. Let's check in with the coach. My friends, this is not the end for us. Let's be really focused. Let's calm down, guys. If we weren't meant to win here, we weren't meant to win here, but at least let's play the Dota that we want to play, yeah? That means no stressing each other out. That means taking moves cleanly. Yeah, exactly. Our ninja way the entire time. Ninja way. Guys, I truly love each and every one of you. I'm super proud of everything that we've done so far. Let's not let it end here, though. Yeah. Trust in each other. Good, William. It's what got us this far. Even if we're behind, let's find ways to win, yeah? They found a way to win, we can find a way to win too. Yes. Believe in each other and have trust the entire way through. There we go. That was very inspirational. Team! I mean, again, it's just heartfelt. It's like, that's what you need to hear when going into the game. You just need to like have... Yeah, and he wants to calm him down as well. He wasn't going to do a big speech because they need to be level-headed, and he knows them so well. And Blitz has been around for, a very long time in the Dota scene. Yeah, and again, like we mentioned it in after Game 1, it's like, after that type of game, your Game 2, you don't want to have your coach or anyone saying to you like, oh, this TP was really bad, this pick was really bad. Like, you just need to humanize the game, and like just being able to actually have access to hearing what the coach is saying before games, it's very cool to see. And I think more to kind of add to the post-game, or how excited are we about moving into the next? And if we are, what do you think Thunder Awaken need to say to each other going into this? Because it's not like they've got the weight of SA on their shoulders. They're obviously, playing for themselves. But certainly they're very, very, I think, should be honored to represent their region and do so well. Something like little shits, SA's here. We've got this. Avo was lying in that translation. Avo, you cheeky little git. We know... Well, I'm not sure if I think it's Vintage that would have said that. It was Vintage, yeah. It was Vintage, yes. But talking about SA and their placements and why it really, I think, is just such an achievement for this team to represent their region. TI7 in Seattle, top placement for SA was 13th to 16th. Vancouver, 17th to 18th. Shanghai, 7th to 8th, which was the best they had until TI11 Singapore here, where they have guaranteed top 6, but winning this would move them on to top 4. And of course, Hokori did very well as well. This is now, 3 teams that have placed fantastically from SA. We got 13th to 16th, and Beast Coast, unfortunately, got knocked out 7th to 8th. Just, I think this alone says that maybe SA should get some more slots, maybe, next season in DPC. The fact they are doing so well at TI, maybe we can throw them an extra slot. Who do we take it away from? NA? That's a conversation for another day. But I ain't trying to start anything. I don't want to start any SA beef, but no, I think, some extra SA love after this would be pretty cool. Now, we know Thunder Awaken were very confident going into Game 2 because they picked Sacred Tidehunter. So... It was... we vetoed this conversation. It wasn't easy, though. They picked the Tidehunter for the Broodmother. It made sense. Then it got countered a little bit by the Ursa. He could never actually be that wall, that front line in front of towers, because Ursa would just get there and just
smash right through him. To be fair, though, his lane was quite good. Their laning setup was perfect. Actually got the kill onto Matu on Ursa. Yeah, sorry, T. No, you're right though, because they put the disruptor there, they actually had an advantageous lane. Because they swap up the lane to put Marcy bottom, it works well. The issue is when they rotate bottom, if they don't give away this ultra kill to Brood, the game is probably completely different dynamic. But because they lose that one little clutch mini engagement, the rest of the script, the game fell Liquid's way. So I think you could probably boil down Thunder Awaken losing this game so easily to that fight. Shippo, do you feel comfortable when your Tidehunter has 2 bracers and a Ghost Scepter? No. It doesn't strike with confidence, right? Yeah, I mean, he would just walk into these fights and try and be a body for his team to give vision or bait spells in on him, and then, yeah, if Ursa goes on him, he has to have a Ghost Scepter or he'll just die. Having to itemize like that, it feels terrible. And Dark Mago on the Ember that game, we saw a lot of movement from Mickey on his puck. Did we see, enough from Dark Mago? Maybe even too much. Like, he rotated down bottom when he was level 5. He did get a kill, but it kind of snowballed into the series of events in which Zai eventually ends up getting an ultra kill, which was a huge boost for him, and the whole lineup of Liquid. It just activated them earlier. Yeah. He dropped way down in net worth. It was, yeah, it was too much. I think they have some pretty obvious issues, which maybe gives you confidence going into Game 3 because it's easy stuff to fix, honestly. And also Matu on the carry. The players, I do believe, will be joining us on stage in roughly 30 seconds, so we'll be going into the next game. We're very ready for this as well. It's been a lot of emotions today, guys, I feel. It's just the fact that this series, for example, like this, we're going into a single game now. Do you want SA to be able to continue their run? Do you want them to be in top 4? I think most fans would love to. But then, unfortunately, Liquid, they got this Matu retirement situation. So it's like, do you want SA to do really well? Yes. Do you want Matu to not have to retire and stop playing Dota? Split the timeline. No. Like, can we split the timeline right now? Can we have 2 alternate realities, please? Because I can't pick one. I want more. Well, we get more. We don't know which way the storyline's going to go, but it's going to be one game that decides it. Matu here, coming out onto stage, ready to sit down for Team Liquid. And I've got to highlight Matu. We've talked about a lot of his teammates and how well they've kind of, played, or at least how their heroes have been instrumental to the momentum of the game. But Matu, he's been playing what I feel like is just such minimal mistakes. He's played such, so well on so many of his cores. It's just impressive. Just very stable. In Game 1 and in Game 2, he was on point with his plays. In Game 2 as well on Ursa, he was aggressive enough. Wasn't really going across the border way too much behind enemy lines, but was always there to dish out the exact amount of damage needed to take down the gyrocopter, in example. I just don't know what Liquid will look like when Matu leaves, because he is so instrumental. Like, their drafts built... Oh, don't talk about this right now, please. Save for the moment. He's here. Sorry. Oh. That's the next TI conversation. Oh, okay. Please. Okay. He's still on our screens. He's still on the screen. Well, not right now. That's Boxy. But okay. Matu's still here, guys. Let's pick some Ursa. I also find it very strange in esports that people are like, yes, I'm retiring. But in normal sports, it's like, okay, I'm a little bit over the, I'm a little bit kind of down. I'm not in my prime anymore. And it's like, Matu, by the way, you're top 6. Yeah. You're really good. You could probably compete next year. But of course, Dota has been around for so long and it takes years to master, and now such an effort to stay on top. Yeah. These teams, have psychologists, they have training facilities, and I think it was, I believe Thunder Awaken actually picked up recently a team psychologist. It's instrumental nowadays, especially when you think about TI. It is the competition that the Dota is obviously fundamental, but being able to keep your team in check, right? Of course, you can't really forget about it. There's the prize money, there's the prestige, there's like the fans, like all of this kind of boils down where when you think about other competitions, you can kind of like gloss it over a bit. You can kind of maybe put it aside, but this is the tournament. Yeah. Other competitions feel very much like, okay, it's an esports competition. TI, it's just something different because it's where true competitors, spirit comes out, and if you're going to win, you have to go up against everything because it's just so much pressure. You've trained all year for this, the prize money.
everything else, you know, the competition is nuts. If you're a Dota 2 player, this is literally your dream since the first competitive match that you have. Like, you're just looking towards TI. I think other esports, you know, players from look at the TI. They also want to compete here, but... Well, it looks like we're ready then. It's going to be game number 3. Let's go into the draft. 5 seconds remaining. Team Liquid versus Thunder Awaken. Game 3. Welcome back, and the teams are going to be ready to start drafting. So Blitz behind Team Liquid, and also Vintage will be behind Thunder Awaken, and one of the most important drafts, because this is the last game of this match during main stage. The winner of this will move into top 4, and they'll be playing next weekend in the finals, joining teams like Team Secret, Aster, and Tundra Esports. Who will it be? We instantly see some adjustments coming from Thunder Awaken. They ban out the Brood Mother. Don't want to have anything to do with that hero. Meanwhile, Liquid, yeah, Dawnbreaker Tiny. Nothing has changed here. Nyx Assassin did go through, and Lash did go through. Now Thunder Awaken might even have to consider picking up that Nyx very early on, if not the Lash. I think the nice thing though is because Thunder Awaken have first pick, it means that Liquid can't do what happened in game 1 where they took this Lash on the last pick of first phase and just kind of catch them with that. So if they do want to force it on Liquid, at least Thunder have that pick to respond. And this time, yeah, I'm just hoping that they don't get caught out in that trap. Can't you Nyx Lash now if you're Liquid as well? Yeah, is that an option? You can Nyx Lash, you can CM Lash, because of course we mentioned how the CM is the lane counter to Marcy. Lash of course good in the game, CM then enables the Lash wrap the aura. I just feel like CM won't be removed later on. You'll be able to snatch her up. They can do, Lash plus anything right now, I feel. Or, this is where, when it gets to a single game, you win it, you continue, you lose it, you're out. They might change After that. Mickey's first game performance, I think we will see Lash. I was once just again offering a unlikely scenario. You know what? This is my favorite thing about Dota is when it gets to TI, Blitz himself has like spoken on this as well as Puppy. It comes down to them as ideas. They're like, yeah, this team isn't got like strengths and weaknesses. This team isn't better or worse. Like everyone's come in with like ideas, and it's all comes down to who has the best ideas. Are they baiting the Nyx right now? Because not the strongest laner, and later on can be hunted down and killed off by the Tusk, right? Like if you poke yourself a little bit too far out where sentries are, Tusk can always catch you. I feel like it's near not impossible, but Thunder Awaken hasn't presented any flexibility. Actually, I guess they've done offlane Marcy, but then if they are, it's now offlane Marcy for Nyx. It just doesn't feel like a strong opening when you compare it to a Tusk and Leshrac. We've seen how Nyx, back in the old days, sure, is a big counter to Leshrac, but now with how quickly teams play around this Leshrac. Yeah, we've seen him lose today even to a Leshrac. So I feel like if you're Thunder Awaken, you need to counter it in a different form just to keep your draft a bit more open. And we mentioned the CM already. The likelihood of Thunder Awaken banning a Crystal Maiden now in the second phase is quite low, and it simplifies Liquid's opening to next phase because you can just go, CM, boom, please, draft into us. Yeah, last game I think it was Liquid that banned the CM versus Thunder. And they got the Enigma themselves. Is this... Okay, so last time we saw this Winter Wyvern was banned out versus Insania. That's something that we might see once again. It's pretty neat with Lash as well, right? Love the crowd. I'm glad they didn't take the Nyx. I just don't think it fits into them as a team. Like, I want to see Matthew being the one playing the Marcy. I don't think they should throw Marcy into the offlane. It just, I think changing everything too much, especially in a game where your TI life is on the line, is just not their style. I just want them to just pick their comfort. I think that's something that LGD did in not the last series, but the one before. They were saying, yeah, when it comes down to it, you just have to say, we don't care about losing. Play your comfort, play what makes you happy. They did play, Nyx before on 4, but like you said, Matthew probably will be playing that. Sacred, I'm actually much happier with him playing the Enigma than the Tidehunter. I feel that he has had way more impact on the Enigma throughout the games that we have watched. I mean, it's just it's the TI hero, right? If you get to Blink, you get to BKB. As long as there is that innate cancel, you're going to be able to hit some of these clutch holes. Yeah.
They didn't ban out everything though. They banned out the silencer. There are still heroes that are pretty decent versus the Enigma and that can be picked on position 5. Yeah, you still got the Enchantress because you take over the island and can fight. You got the Winter Wyvern for the defending tower, and then the Winter Curse throughout the game. 5 seconds. You still got, again, you Don't mentioned forget the Crystal. Pango. Oh, there's still Pango. Oi. No, 100%. Like, Pango's not been banned. Like, I could easily see Pangolier being important for Liquid second phase, Crystal Maiden being important for the second phase. Like this. We're just going to get the exact same game. Game 1 drafts all over again. I mean, game 1 was a little bit saved by the Lesh on Mickey, but I felt that was sometimes Thunder Awaken pushing a little bit too hard into the enemy jungle. So one of the differences we see, despite looking at game 1 and from game 2, is Mickey on Lesh. How does that play into the early game, Blizzard? I feel like now that the emotions have settled, if we do see a repeat of game 1, Mickey and Lesh will do even better. That's how I see it, at least, because they made some crucial overextensions in that game 1 a couple of times, which did cost them the game eventually. And this is the same setup Liquid have done before. In game 2 of OG earlier today, they had Lesh, Tusk, CM, and then they rounded out the draft with the Bloodseeker and the Broodmother. Very much on their Awaken, they need to make sure that I think they just need to be ready to be defensive a little bit. Sure, their nature of style was to be strong in lanes and to be killing, but when Liquid's already presented this opening, you need to just have layers of fighting at objectives. I don't know, I saw that last game. They were really, really defensive, maybe a little bit too much. Do you double down on that in game 3? When I say defensive, I mean just have maybe in a different way. Yeah. In a way that works, in a better way. But like Undying's decent. You can fight around objectives. Oh, okay. We've not seen a lot of Pudge recently. Like, oh, there you go, look at Panda, but he's getting excited for the Pudge pick. Again, Pudge is this hero that you can buy the Vanguard or a Hood, you get the Axe, you're super tanky. You can basically be what Leshrac is for Liquid, the Pudge becomes for Thunder Awaken. You throw them into the middle of the fight and you absorb that damage. Are you inviting a Lifestealer perhaps here? Yeah. I want to see a hero that either can kill the Tombstone or helps the team disengage in these fights. You either need to get away from the Tombstone or you need to be able to kill it and dictate where your fights are being taken, because Thunder Awaken, they just want to throw down a black hole with a Tombstone on top or play around some cliff, hook you in. They have ways to displace you between hook and dispose on the Marcy. So Is it going to be Pango, Lifestealer, you think, potentially? It's an option. I'm thinking Sniper is also in the pool still, right? Sniper's decent. Like Death Prophet offlane is pretty decent. You pair a mid-trip. I go with Lifestealer. James, you're on fire, man. Literally, he's on fire. Please, someone How many get times have we seen Matu Lifestealer hit Pudges? It's quite telegraphed, but it seems like Thunder Awaken are quite happy to go against it, right? Because now you're looking for an answer to the Enigma. Because you can still lock down a Lifestealer for a little bit. There will be time. They can lock down him a lot. Exactly, right? They have Dismember, as well, these late games, when it goes late, the Pudge gets a refresher too, and then you have 2 bites. So Liquid need an offlaner, or their Tusk needs to buy a Lotus Orb so that they can just put it on Matu and let him go wild in these fights. But also an answer now, I think, to the Enigma, because it's a backup lockdown for Matu in these fights. Yep. When you look at the statistics of Pudge versus Lifestealer in pro pubs, this is like 8K plus games, Pudge has like a 58% win rate against Lifestealer. Just the fact that you get so tanky so quickly and join the fights, Lifestealer's always playing a little bit of catch up in regards to what item you bring. Yeah, but that's also the nature of pubs, is that you're constantly hunting heroes, and Pudge early on. That's Thunder Awaken. Right? Yeah, definitely is. But they do also have a ton of BKB piercing lockdown, like Shippo mentioned earlier. And I love the Slardar. Actually, they're the ones that ban out the Slardar. They just don't want to play against this old school ultra aggression with Lifestealer constantly being infested in the Slardar, jumping the backline, something that we haven't seen that much up to today and yesterday. 10 seconds remaining. Also the puck banned out, so they're literally getting rid of all these infest bones. Yeah, on Thunder Awaken side, I do want to see a little bit more kill threat coming out. Right now they don't have a playmaker outside of Marcy just leading, or they have to land a hook. Is Lina an option for them? You just get that mid, you're playing into a Lesh, it feels like such a natural counter to the Lesh in the lane. Might be a little bit difficult versus the Tusk, and it's banned out instantly. She would have been really nice for sure.
something with just kill threat on Lesh would be so nice because your Marcy can just rotate at any moment with a TP or dies and then refills the bottle, and you just that jump onto Lesh. It's so easy to kind of displace him and kill him. And you have these really nice ways to fight around the runes. Like if they want to commit in on Liquid, you have that tombstone that you can place if you bring both supports. I'm just assuming that they're going to want to do a lot of fights around mid because they have such aggressive supports on both sides. Are they just going to give Dark Mag or another Spirits? Yeah, yeah, I would say Spirits. It's like the Storm or the Ember, just something to cut into the backlines, and you need a hero that actually opens up the vision of the fight so that the Undying knows I need to Tombstone, or the Enigma has that Black Hole. Marcy has someone to play with as well, so yeah, Thunder Awaken going for the Spirits. And now, for Liquid, most likely the offlaner. Sai Pango. I still kind of like Death Prophet. I don't know, we haven't seen it a lot, but just a Death Prophet into Undying Pudge should fare pretty well. It gets super tanky, and it's not a traditional like enabler for Lifestealer, but it just gives. With the Siphon, it's always kind of nice. Versus the Undying, it's also really nice. With the Tusk, you're strong in the lane. Yeah, but Jane said Pango, so I have to go with Pango. It has to be Pango, yeah, you're right. It won't be now. I mean, I love how they play Death Prophet because Zai's really good as well about around fighting the Roche Pit as DP because he'll just use his body to sort of split up the enemy team and get in there to make space for the Roche to be taken or for his team to find the right targets they want. He's great at being just like a bait. You're a problem that needs to be answered. Like even solo Black Hole on you is. What about Clockwork? That's a little bit crazy, all right, relax. Okay, James, relax. Relax, James. He's right. James knows. You should have just... Don't doubt yourself, man. Don't doubt yourself. You guys made me doubt myself because No, we agreed with you. It was hard-working. But anyway, who do you think's got it based off the draft? I kind of favor Liquid a little bit just because the Pango will now be the answer for the Enigma throughout the entire game. And they just have these heroes that they have excelled on immensely throughout TI so far. And even Blitz, look, he's now going player to player, giving them the little motivational speeches and whatnot. Showing off the arms as well. Look at my muscles, I went to the gym this morning. Oh, what? Oh, everyone gets a handshake, but Zai gets a fist bump. Don't read into it too much. He was upset with Game 1 performance. Yeah, don't miss a swashbuckle on this Black Hole. Bye! Yeah, that did happen a few times in Game 1. But yeah, so you're sorry, to wrap up, I really like Thunder Awaken's draft. You like Thunder Awaken? The amount of like BKB piercing stuff they have. You're way too reliant on Pango to cancel them later. I see Lesh, I see Mickey. I'm all in. That's fair. It's going to be a close game. Oh, it certainly will be, and it will be the last game of the main stage. But before we go into the match, we're going to have a post-draft interview with Blitz. Blitz, thank you so much for taking time for us once again. Very interesting draft here that we see coming out, but I did want to talk to you about that first game one. Seemed like you guys should have had that one in the bag. As Seb said, the games that you should win are the hardest ones to lose. How did you guys recover? How did the team talk to each other to have a fantastic game two? I mean, I don't think you should really win any game. They're a really, really good team. You got to close out games here at TI. I think it's pretty disrespectful to just imagine like, oh, we're supposed to win that. Like, they did all the right things. Full respect to them. They deserved it. Absolutely. Really good job by them. All right, fantastic. Such great sportsmanship that we've seen so many times. I wish you the best of luck in your last game of the day, and we will throw it straight to the game. Let's head to our casters. Thunder, they managed to take that game one in spectacular fashion. Lightning in the hands. Afterwards, we're at the pop-off from their coach. Respect SA, you shits. Thunder in the mouth. But it's easy to have that kind of pop-off after that game one. How do you do it after that game two, which was probably a demoralizing loss? Yeah, that one was maybe a rougher game to lose than the first one, because now you're going into a game three and you had all your momentum disrupted. You really got controlled on the map. It felt very clinical. I always thought those types of games can be, they're rough to come out of. चलिए आगे बढ़ते हैं यस नहीं ऑलरेडी हो गया अब एनर्जी शाम के 6:30 हो चुके बोल सांचे दरबार की जय। और ये हमारा आज का आखिरी गेम हो सकता है, होगा ही क्योंकि यहाँ पर एक गेम क्रैक। हाँ जी 6 सेकंड मतलब अभी तो गेम स्टार्ट होगा। नहीं अभी यहाँ पे रून के लिए फाइट हो रही है और ये देखिए रस्सी टाप रहे जैसे गांव में नहीं थे जैसे छोटे छोटे बच्चे रस्सी टापते थे भैया पज का आरकाना। अबे आरकाना है वो नूब। अरे आप हेडफोन पहन के बात कर लो पहले तो। इट्स ओके एक्चुअली गाइस हमारे स्टूडियो में जो हमारा इतना महंगा स्टूडियो उसके अंदर एक और शख्स है हमारे साथ और उनका नाम है अमृत गौरव। अब उनको वहाँ हेडफोन नहीं मिल रहे क्योंकि पीछे रखे होंगे आपके तो।
ओह भाई, ब्रैड, यू आप- आउटप्लेड हिम। आप तो इनका रून लेके भाग गए। भाई सीधी सी बात है, ये लो। अच्छा जी हाँ बिल्कुल। नहीं आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। अभी आ जाएगी, अभी थोड़ी देर में आ हेलो? जाएगी। यस आ गई, तारे गिन गिन यहाँ जो तेरी। और भाई भाई ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन है यहाँ पे पीजीएल की। तीनों लेन पे एक हल्का सा सीसीटीवी लगा दिया, गोप्रो लगा दिया, और जो मिड पे लड़ाई है वो है एम्बर स्पिरिट वर्सेस अरे आपकी तारीफ फैंगो नहीं हो रही की, थी सब। मिकी वर्सेस डार्क मैंगो। हमारे स्क्वाड्रन बहुत जल्दी पीजीएल जाने वाले हैं, ऐसा इन्होंने। सैम डीन्स हैं। हाँ मतलब इंडियन देसी सैम डीन्स हमारे। सैम डीन्स को अटैक आ जाएगा। अरे इट्स ओके मैन, आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव था। लकीली हमें 2-0 मैचेस मिले, बट कल का दिन इट वाज, ट्रस्ट मी, इट वाज हॉरेंडस। ओके देन दैट हुक बाय व्हाट्स द नेम, पकास यार मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड। देखो इस वक्त टावर कौन तोड़ेगा? ये गेम लिक्विड जीत गई। चलो क्या कहता है? या लेट्स गो लिक्विड, लेट्स गो लिक्विड, लेट्स गो लिक्विड। आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सॉलिड से आप नहीं, मैं दिमाग वाला इंसान हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, आप समझा दो। ठीक है, आप जो लगाया, पहले तो बताओ दिमाग कहाँ से आया आप? देखिए क्योंकि ये तो बात ये आती है, रेंट इनको अभी जल्द से जल्द अर्ली गेम इनको कुटाई करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी जी। लेट गेम नहीं ले सकते। अनडाइंग की चारों स्पेल भी पता है आपको? देखिए करते क्या है वो पता है। क्या करते हैं? तो भाई रुक जा, बहुत बड़ा आने वाला है, बहुत बड़ा। देखिए पहला जो होता है ऐसे मारते हैं, डालते हैं एक जगह पे, वही सबकी ना स्ट्रेंथ जो भी रहता है वो चूस लेते हैं, डीके बोलते हैं। हाँ सेकंड स्किल जो रहता है, जितने भी आसपास होते हैं यू नो, अगर कोई प्लेयर होता है या जो भी ओपोनेंट होता है तो उनसे ना एचपी चूस लेते हैं। तीसरा जो होता है वो है उनका चौथा जो होता है बहुत बड़े हो जाते हैं। उस बड़े होने से क्या होता है? बड़ा तो बहुत कुछ हो जाता है, आपका दिमाग जितना बड़ा है। अरे देखिए वो बड़ा हो जाने से उनके तो एक तो स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट सब एचपी वगैरह बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसका मेन यूज़ क्या होता है? उसका मेन यूज़ ये होता है कि जब आप गैम आपको मैंने बता दिया ना 4 स्पेल। नहीं बट आपने ना नाम तक नहीं बताए, एक का नाम बता देते ना। अरे टॉमस्टोन तो बोला, टॉमस्टोन बता दिया फर्स्ट का, मैंने आपको आंसर बताया था। ठीक है, सेकंड को क्या बोलते हैं? आत्मा खींच लेता है आसपास की। हाँ हम हिंदी वाले हैं, हम क्यों इंग्लिश वाले फॉलो करें? हमारे कभी नहीं करी आपने, इंग्लिश कभी नहीं करी। नहीं आपने इंग्लिश कभी नहीं करी। नहीं अभी जो आपने टीवी खरीदा है, कहाँ से पेमेंट आई थी? आपने कौन सा टूर्नामेंट कास्ट किया? वो भी तो हिंदी में कास्ट किया था। इंग्लिश में क्या था? आप बेकार की बातें मत करिए। अरे टीवी जो आई थी वो दूसरे वाले इवेंट जो हमने हिंदी करी थी, जो आप उसको बोलते हैं फ्रेश गोलम। उसके अंदर मैजिक एम्पलीफिकेशन हो जाती है एरिया में, जहाँ जहाँ वो होते हैं ना। हाँ ठीक है, और बड़े नहीं हो जाते वो। अरे वो बड़े हो जाते हैं, आप देखे नहीं हो। मुझे नहीं देखा। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, अब चलो अब ये बता दो कि हमें हमारे ये चाहिए। ओ मारा फंदा ऐसे करके ना, उनके तो लंगड़ जैसे 15 अगस्त में जैसे होता ना, और जैसे मारा और उनको खींच के ले आए और जाय को मौत के घाट उतारते पे हमारे टीम थंडर अवेकन के कैरी PUDG पंच। लिक्विड वर्सेस लास्ट गेम है, बता देता हूँ तुझे मैं, ठीक है। डोंट गेट यू नो, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि व्हाई पीपल आर सो ऑब्सेस्ड विद एनिग्मा। आई डोंट गेट इट मैन, आई जस्ट डोंट गेट इट। इसीलिए वो वहाँ पे हैं और हम यहाँ पे। कुछ तो रीजन होगा। एंड ये लूजर ब्रैकेट है। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। टीआई देखिए एनिग्मा के साथ हमेशा वो गेम चेंजिंग पोटेंशियल तो रहता है। एंड आई थिंक फॉर थंडर अवेकनिंग सीक्रेट ने जो पहले गेम में जो जलवे दिखाए थे, आई गेस उसी के ही फिराक में रहेंगे। एंड पॉसिबिलिटी है। टावर कौन तोड़ेगा बस ये बताओ। अरे टावर सब गेम सारा गेम टावर का नहीं होता क्रैक। कभी अगर आप अच्छा ठीक है, आप 250 किल ले लो ना, मैं आपके सारे टावर तोड़ दूंगा ना जब तुम देखिए बात यहीं पे आती है कि वॉम्बो कॉम्बोज कैसे होने वाले हैं। मार्सी जाके इनिशिएट कर सकती है, ठीक है, बट सब सारी बातचीत ना आती है। सो हैप्पी मैन, बोले आप बेकार की बातें मत करो, फिर से आप काम करो। एक फिर 3 मैन ब्लैक होल लगेगा, हाँ ठीक है, उसके बीच में उसके अंदर तीनों कोर्स मर जाएंगे लिक्विड। अरे सुनिए तो हाँ। उसके बाद अनडाइंग के वहाँ पे ये टोम्बस्टोन चल जाएगा, फिर स्पेल्स चल जाएंगे। कौन से स्पेल्स? हाँ
फर्स्ट स्किल, सेकंड स्किल, अल्टी, ये अंडाइंग की मतलब डीके एक बार चलेगा और सोल्डर पे एक बार चलेगा। हाँ चलते रहेगा, नहीं स्पैम करते रहते हैं यार। करते रहेंगे। ब्लैक होल 10 मिनट का है क्या? अरे नहीं, अरे उतने टाइम में इतना स्पेस बिल्ड हो जाएगा, फिर वहाँ पे पज भी वहाँ पे चल जाएंगे। हाँ रॉट वॉट ऑन कर लेंगे, रेडियंस भी बना ही लेते हैं ना थोड़ा सा डैमेज कर सकते हैं, मतलब क्यों नहीं कर सकते, उनकी मर्जी। ऊपर से फिर एम्बर का मतलब वो चक्कर करता रहता होगा। जो एम्बर सेप्टर खरीदेंगे और रिफ्रेशर खरीदेंगे, फिर क्या करेंगे वो 5 रेमिनेंट फेंकेंगे, रिफ्रेशर करके 5 और फेंकेंगे और डी दबा देंगे, वहीं पे सारा डैमेज पड़ जाएगा। एग्जैक्टली, दैट्स इट, दिस इज इट, दिस इज टीआई क्रैट। हमने इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल होते हुए देखा है, तो आज क्यों नहीं? आप स्केप्टिक क्यों हो रहे हो इतना? लाइक व्हाई आर यू अ पेसिमिस्ट? नॉट अ पेसिमिस्ट, ही इज अ रियलिस्ट। हर जोली मेरी है मोहम्मद, फिक्सेस के भेजे में डाल दे बाग खाली इसका। बट यहाँ पे लिक्विड के इंसेनिया जो क्रिस्टल मिरन के लिए थे, उनको पिक ऑफ कर लिया है थंडर के सेक्रेड ने। बट नो डाउट जस्ट बिकॉज सेक्रेड इज प्लेइंग एनिग्मा, आई एम हैविंग हाई होप्स बिकॉज वो अच्छे प्लेयर हैं। उन्होंने इससे पहले भी द सीकर वाली गेम के अंदर बहुत प्यारे, बहुत लाजवाब, बहुत सुंदर, कहते हैं ना सर्वश्रेष्ठ ब्लैक होल मारे। क्रैट, आई थिंक आई हैव फिगर्ड आउट हाउ टू, कि आपको कैसे पता चल सकता है कि टीआई में इतना एनिग्मा के लिए लोग ऑब्सेस्ड क्यों हैं? क्यों? Play a game of Dota with fixes where he plays Enigma. Enigma की अगर वे पहली स्किल का नाम भी बता देंगे ना, नाम बदल दूंगा। क्या रखेंगे नाम? बताइए। पहले आप नहीं अब स्किल का नाम बताओ, हम नाम देखेंगे। नहीं मैं दूंगा नाम, ठीक है क्या? ठीक है, और वो आप अपने इंस्टाग्राम पे नाम अपडेट करोगे for 24 hours। हाँ for 24 hours, महीने तक हो जाता। ठीक है, ठीक है, 1 महीने तक स्टोरी पे डाल देते हैं। चलो नो, स्टोरी वोरी पे हम नहीं चलते हैं इतने सस्ते में। चलिए ट्विटर चेंज करेंगे आप। ट्विटर है ही नहीं। और कुछ नहीं, इंस्टाग्राम, स्टीम का अकाउंट, स्टीम का क्या हो तो 2 मिनट में मैं नाम रख दूं। हाँ तो ठीक है ना, स्टीम का नया आईडी वो रहेगा। क्या दोगे बताओ? 1000 रुपए। ठीक है, मान लो, अभी मेरा नंबर है जीपे। गलत बोला आपने। नहीं, मैलेफिसेंट उसके अंदर थी। अरे इतना तो पढ़ा लिखा मैं भी हूँ भाई, तमीज से बात करोगे? नहीं, अब आप 1000 रुपए कृपया करके पेटीएम कर दीजिए, या गूगल पे भी एक्सेप्ट करते हैं, कैश भी लेंगे। मैं अपने फादर साहब से पूछ के कर सकता हूँ, वैसे मुझे अलाउड नहीं। बट यस, ओह नाइस ब्लैक होल यहाँ पे लाइव स्ट्रीमर को पकड़ लिया है, और आई थिंक द टाइम विल बी इनफ। मटुम्बा मैन ने बहुत ब्लैक होल खा लिया पिछले 1-2 घंटे के अंदर। जब ये लाइव स्ट्रीमर खेले थे उस टाइम भी सेक्रेड ने जो इनको ब्लैक होल के अंदर इंक्लूड किया था बार बार, इट वॉज हेल एनोइंग। इन दिस गेम में भी वो खेल रहे हैं। सेकेंड गेम के अंदर तो इट वॉज लिक्विड रन, बट आई विश कि जल्दी से कुछ और इम्पोर्टेंट मसला देखने को मिले। पांडामूज प्लेइंग अंडाइंग के होते हुए स्टिल दे प्लेइंग विद पैसिव। इट्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट इट। आई थिंक यहाँ पे फाइट फोर्स करना चाहेंगे टीम लिक्विड के प्लेयर्स, क्योंकि दे नो दैट एनिग्मा ब्लैक होल नहीं है, तो उनका जो एक मेजर डर था वो हट चुका है, इसीलिए इतना ज्यादा डाइव कर रहे हैं। कोई ना तो यहाँ पे हुक होगा। ये देखिए आ गए यहाँ पे, ये मारा लिया। देखिए इसी ऐसे ही अगर पिक्स 2-3 निकाल लेते हैं और पच फैट हो जाते हैं, कि और यही करना है। बर्फ की सिल्ली तोड़ दी, मिकी को चेस करना चाहते हैं, बट आई डोंट थिंक उनके पास इनफ डिसेबल्स है, बिकॉज उन्होंने सीरिंग चेंज ही नहीं लिए हैं फिक्सेस। ही इज प्लेइंग ऑन फ्लेम गार्ड एंड स्लाइट ऑफ फिश, जो कि एक आइडल कॉम्बो भी है। एक आधा लेवल का फिर भी ले लेते तो डिसेबल आ जाता, बट इट्स ओके। अभी भी स्कोर जो है वो अभी थंडर वेकन के साइड में, बट आई डोंट लाइक थंडर वेकन्स ड्राफ्ट टू बी वेरी ट्रू। कुछ तो सोच समझ के लिया I totally get it, but just my opinion, man. You are like, I'm started to have my own opinion. No. Why? क्योंकि आपकी जिंदगी आपके हाथों नहीं है। किसके हाथों? उनका नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, बट आपको भी पता है। Yes. Okay. Yeah. I think Liquid lost 2 players. Okay. The time is 9:10. I will talk. I will record this demo and I will forward to this. मुझे लगा मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। मालिक का नाम ले रहे। क्या पता आपके मालिक कौन है? सबका मालिक, सबका साईं बाबा। चलिए साईं बाबा ही सही, बट 1000 रुपए पहले जीपे करिए। मैंने अंडाइन का पूछा था। नहीं, ये तो स्ट्रीम पे गए। हाँ ऑन स्ट्रीम दिखाओ।
ऑन स्ट्रीम दिखा भी देंगे, सुनवा भी देंगे। सीधी सी बात है, आपको पता था मैं बहुत अच्छा इम्प्रेस हो गया हूँ। नहीं आज स्विमिंग जीत जाएंगे अभी तो, आप स्विमिंग भी कर स्विमिंग के भी चलिए यहाँ पे लगा दीजिए। स्विमिंग भी लगा लीजिए, वहाँ पे नलिफाई हो जाएगा, डबल और नथिंग। हाँ डबल और नथिंग, मतलब चलिए 10-10 हज़ार लगाते हैं, 10-10 20 लगा लो। बट आपको पहले दोनों को डिपॉजिट करना है 20,000 रुपए। मैं एस्क्रो बन जाता हूँ, आप मेरे को पैसे दीजिए, जो जीतेगा मैं उसको दे दूँ। यस बट उसको दे दिए जॉनी। नहीं ऐसे दे चुका हूँ जॉनी, दे दीजिए। मेरे सामने जाएंगे नहीं आप। मैं जॉनी ना आपके बहुत बड़े भक्त हैं, समझ रहे हैं? तो ये मतलब स्कैम आर्टिस्ट। ये हमारा स्विमिंग खत्म होते होते वो पैसों का कुछ तो गायब हो गया होगा। 2 स्नीकर आ जाएंगे नहीं? आप पहले भेजो जॉनी को 20,000। मैं भेज दूंगा, बट पहले आपको पता है हेवी चांस कि आपको जीतने के बाद भी पैसे नहीं आपके देते गायब हो जाएंगे और आपके वाले भी गायब हो जाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक अच्छा मिडिलमैन, जैसी फिक्सेस ने ट्रांसफर किया, गोवा की फ्लाइट्स बुक हो रही है, एक ऑनेस्ट मिडिलमैन हो। अरे recently you went to Goa. I heard you had a lot of fun there. अरे ओशन शर्मा और अंश दाई के साथ, मतलब गोवा had to be फिक्सेस से स्कैम हुआ है गोवा में। फिक्सेस से एक ऐसी लोकेशन पे ले गया ओशन और अंश को, ले जाके बोलते हैं दिल चाहता है कि शूटिंग यहाँ पे हुई है। बट आप ये सोचिए उन दोनों बेचारों ने अपने ब्लॉग में डाला होटल बुक किया, यहाँ पे म्यूजिक साइंस म्यूजिक था भाई। ही इज द इंटेलेक्चुअल गाय, उसको ऐसी जगह पसंद है, क्यों जज कर रहे हो यार? डू यू रियलाइज जाके चक्रिया घुमा रहा है इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने उसको ऐसे आप बोल रहे हो? आई डोंट थिंक इट्स फेयर। और यहाँ पे पांडा मुखी जो पिटाई होने वाली है, और यहाँ पे टैक्ली मॉन कर रहा है, रुकिए, मार्सी आ चुकी है, और उनको लीव करके पीछे भेज देंगे। और ये देखिए, ये जो क्रिस्टल मेडल ओह मेट 150 रुपए की अल्टी मारी थी पीछे। अरे देखिए तो सही, अनडाइंग भी अभी जिंदा है। ये कहाँ से आ गए? अरे क्या करने आए थे? अरे मिलने आए थे, हैप्पी दिवाली बोल के चले गए। हैप्पी दिवाली आपके लिए, सब बलिदान दिया है फुल पावर। अरे यार क्लॉकवर्क देखने को आज मुझे बिल्कुल नहीं मिला। आई लव दैट हीरो। आपको छोड़िए, मिड टर्रेट जा रहा है। अब देखिए पुश भी आ रहा है। क्या बात कर रहे थे, पुश नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्रैट सी सब हो रहा। फिक्सेस कहना चाहता है ही नोज डोटा बेटर देन। ऑफ कोर्स एमएमआर की बात करते हैं, मतलब चलिए स्विमिंग वगैरह तो होती रहेगी, डोटा 1v1 स्ट्रीम होना चाहिए आप दोनों। नहीं अभी स्विमिंग टिप्स ये हम लगाने वाले हैं, और हो चुकी है बात 10-10 हज़ार के लिए, सब के लिए। नहीं क्रैट यू हैव टू बी। दिवाली में गिफ्ट नहीं दिया मुझे फिक्सेस भाई। मेरा प्रेजेंस ही इतना बड़ा गिफ्ट है आपके लिए, और कितना गिफ्ट चाहिए आपको? नहीं चाहिए ऐसा प्रेजेंस हमें गिफ्ट भाई। लेट पहले तो लेट आते हैं, उसके बाद कह रहे मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। एक दिन पहले मुझे मैसेज किया, एक दिन पहले मैसेज किया कि क्रैट मैं ना लेट आऊंगा, प्लीज हैंडल। मैंने कहा ऑलवेज बेबी डोंट वरी, विल हैंडल। देखिए कल इसको पता था, इसने मेरे पे ऊपर न्यूज़ कर लिया है, इस बार तुझे मैसेज किया। ये इतना ज्यादा आलसी है। देखिए ये सब क्या बातें कर रहे हैं। देखिए ज्यादा सोना होता तो सीधा बोल दीजिए, नहीं पूरी नहीं हुई है। देखिए हम सो जाते हैं 12 बजे तक। कल हम 12 बजे से पहले सो गए, बट जब सुबह हम उठे हमें लग रहा था सर पटक वाला, चटक वाला। तो why don't you stop consuming, you know, aerated drinks? देखिए अब यहाँ सरवाइव करने के लिए हमें एरेटेड ड्रिंक्स लेना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ टिक नहीं। Try to dilute them ना। रेड बुल में पानी मिला के थोड़ी पियेंगे। Try to dilute it। ऐसे थोड़ी होते हैं। बट ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे सेटअप तो अच्छा था यहाँ पे। पल्स अच्छा बंद नहीं कर रहे, उनकी माना पूल पूरा खत्म हो जाएगा, बट जाई ने बहुत ज्यादा डैमेज ऑलरेडी ले लिया है। बट बैक ऑफ कर जाएगा। मार्सी की बहुत कम एचपी है, बट दिस एम्बर हैज नाइस अमाउंट ऑफ डैमेज मैन। ओह अभी तो बिना अगर यहाँ पे मेनस्टॉर्म और होता ना तो मजा आ जाता। अब थोड़ा सा प्रेशर तो नहीं, यहाँ पे बैक ऑफ कर रहे हैं, ज़्यादा माना नहीं है, एंगेज नहीं करना चाहेंगे। प्लस बारंबार ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था, बट यहाँ पे देखिए पच ने फार्म कलेक्ट करते हुए जल्द से जल्द अपना एग्रिम सेप्टर लाना चाह रहे हैं। और ये पज, I don't understand why Pudge is being treated as a core one, because if you are bad with hooks, Pudge is dead, and just because the third skill is active and you become a little more tanky, I still don't get it, man. After the scepter, he will go for BKB, blink, and the only thing he will be doing is blink, BKB, ult.
आई थिंक द आइडिया इज कि किसी भी प्लेयर को एक हुक करके अगर ले आए तो थोड़ा हुक सा करके नहीं लाएंगे, बीकेबी बना के उनके अंदर चले जाएंगे और थर्ड स्किल ऑन कर लेंगे, वो मरेंगे ही नहीं। अरे वो नहीं मरेंगे, बट अगर उनको किसी ऑपोजिशन को ले आते हैं ना अपने साइड तो बहुत ज़्यादा इनेबल हो जाएंगे और सीक्रेट अपना ब्लैक होल यूज़ करने के लिए। एंड देखिए यहाँ पे मैथ्यू बेचारे कल जो कुरियर के पीछे पड़े हुए थे, अब टीम लिक्विड ये फाइट फोर्स आउट करने की कोशिश कर रही है, बट यहाँ पे बैकअप स्वरूप आ चुके हैं एम्बर स्पिरिट और फ्रीजिंग फील्ड का इस्तेमाल। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने वाला है, जाहिर सी बात है थंडर अवेकनिंग को यहाँ पे रेमनेंट टीपी आउट करेंगे। काफ़ी लो एचपी पे वापस से थंडर अवेकनिंग के प्लेयर्स, बट कोई नुकसान यहाँ पे नहीं होता हुआ और टिप करते हुए अपने भाई को बचाने के लिए बचा लिया उसको, पता है ना। हाँ वहाँ पे जो डिस्पोज किया था इट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज काफ़ी एचपी लूज कर दी थी एंड एम्बर वांटेड टू गो लिटिल क्लोज टू द क्रिस्टल मेडन एंड यूज सीलिंग चेंज सो दैट उनकी अल्टीमेट कैंसिल हो जाए, बट एज सून लाइक ही रियलाइज दैट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है और इफ़ आई स्टे इन दिस प्लेस फॉर एनी अदर मोमेंट वो मर जाते हैं। बट इट्स ओके, अभी यहाँ पे मिड पुश करते हुए देखेंगे डायर्स, उनका जो मिड टावर अभी भी खड़ा हुआ है वहाँ पर, और वहीं पे अगर टावर की कंपैरिजन करें देन इवन रेडियंट्स ने भी अपना सेफ लेन का टावर खो दिया, वहीं पे डायर्स ने भी अपना सेफ लेन का टावर खो दिया। अगर किसी भी हालत से अगर लिक्विड ये मिड टावर तोड़ लेती है देन एक टावर एडवांटेज उनके फेवर में आ जाएगी और ऑलरेडी 1000 ऑलमोस्ट 1000 गोल्ड की जो नेटवर्थ है वो लिक्विड के फेवर में है। अभी के लिए तो आई थिंक लिक्विड ने काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया है ये अर्ली गेम का। ट्रांजिशन कर रहे हैं हम उस मिड गेम फेज के तरफ जहाँ पे एनिग्मा को मिल चुका है अपना ब्लिंक डैगर, तो थोड़े से एनेबल होने वाले ज़रूर हैं। एंड दिस इज़ अ मोमेंट जहाँ पे थंडर अवेकनिंग कैन थिंक ऑफ अ स्मोक गैंग एंड ट्राई एंड गो फॉर दैट रोशान, बट रोशान के लिए आई थिंक गुड डैमेज नीड्स द एडिलॉन्स हैव टू बी देयर। और काफ़ी अच्छे यहाँ पर न्यूट्रल आइटम आते हुए वैम्ब्रेस मिला लाइफ स्टीलर को एंड रिंग ऑफ अकीला मिला यहाँ पर, तो बट सीलिंग चेन बट दैट ये कैसे हुक मिस कर दिया? अरे वो स्टिल टारगेट नहीं था ना, बट फिर भी थोड़ा तो प्रेडिक्ट चाहिए था। बट एनीवेज यहाँ पे अपनी अल्टीमेट एबिलिटी चला दी। फ्रीजिंग फील्ड का इतना ज़्यादा प्रकोप होता हुआ कि ना सीक्रेट बचे ना उनके साथ डार्क मैगो, और यहाँ पे धीरे धीरे जो ख्वाहिश थे जो सपने थे थंडर अवेकनिंग के धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। एज इंसेनिया एक और डबल किल, मैथ्यू ने कोशिश ज़रूर अच्छी की थी बट इट लुक्स लाइक अ टीम वाइप और टीम थंडर अवेकनिंग का जो झटका था वो उन्हीं के ऊपर ही गिर गया। बट यहाँ पे बायबैक हुआ है टस का, सो इट्स नॉट अ बिग ऑफ अ विक्ट्री, बट अगर टावर वावर चला गया देन येस थोड़ा डेंट तो ज़रूर पड़ेगा। बट अभी क्या करेंगे जो हमारे वाइब हमारे लशराक है, ही विल बी यूजिंग डायबोलिक करेक्ट सो दैट इजीली वो टावर को ढेर सारा डैमेज यहाँ पर देकर गिराने की कोशिश करेंगे। बट आई वांट टू सी कि ऐसा क्या मारा कि भाई अभी तो इट वाज क्रिस्टल मेडन अल्टीमेट जिसके वजह से रेडियंट्स को बहुत डैमेज पड़ा, जैसे कि एनिग्मा की बात करें एंड एवरी अदर पर्सन राइट नाउ लाइक एम्बर। अभी ऐसी सिचुएशन में व्हेन पंच वाज देयर, ये देखिए मर्सी यहाँ पर है एंड ओके दैट वाज अल्टीमेट, जब वो पंचेस मारते हैं तो एक बफ सा निकलता है एंड उसके लिए साइलेंस भी होता है। बट जाए एंड एवरीवन दे मेड श्योर कि यहाँ पर जितने भी लोग जिंदा हैं उनको भी पनिश किया जाए। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बॉक्सी ने बायबैक करके क्यों आए एंड कितना एक साई ऑफ रिलीफ मिला है लशराक को कि भाई यस आई डन समथिंग गुड। मिड का टावर थोड़ा सा टैंक किया, बस स्पेशलिस्ट एरे भी आ चुका है, इट्स अ वेरी गुड आइटम। मेरी हीरोज़ के लिए है 5 एट्रीब्यूट 10 डैमेज मिलता है और एक कूलडाउन के बाद डबल हिट निकलते हैं। और यहाँ पर बीके भी अप हो चुका है एम्बर स्पिरिट का। सबसे ज़्यादा सर्वर में गोल्ड है इस वक्त मिकी के पास। मिकी इज़ कंसिस्टेंट एज फिश, बिकॉज ऐसा कोई गेम नहीं है जहाँ पे मिकी बिल्कुल फॉल आउट होता हुआ देखिए, फ्लैट आउट होता हुआ देखिए, हर बार अपनी टीम को काफ़ी कंसिडरेबल एडवांटेज दिलाने की कोशिश करते हैं। अब जो हमारे लिक्विड इंसेन है, ही इज़ ऑल्सो अराउंड यू नो जाए अराउंड निशा कि वो अपनी टीम के लिए अपने प्लेयर के लिए एक सपोर्ट बना सके। देख इस गैंग के अंदर इंसेनिया वाज सो डेवास्टेटिंग, द फ्रीजिंग फील्ड जान निकाल ली यहाँ पे थंडर अवेकनिंग के प्लेयर्स की। एक 4-मैन स्मोक यहाँ पे इस बार एनिग्मा का ब्लैक होल का इस्तेमाल करना चाहेंगे। अगर यहाँ पे किसी तरीके से जाहे का पिक मिल जाता है तो वो बेहतरीन होता, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे फिर से मर्सी ने इनिशिएट करने की कोशिश ज़रूर की थी, बट वाओ एक सेविंग हुक, बट ये इतना बड़ा गोला आ गया है और यहाँ पे टॉमस्टोन डाल दिया गया है। हमें पता है टॉमस्टोन के अंदर कभी फाइट लेना उचित नहीं है, बट उसके बावजूद भी जाए काफ़ी ज़्यादा डैमेज डिश आउट कर रहे हैं। सीक्रेट
बेचारे अभी तक ब्लैक होल नहीं मारे थे, अफसर का वेट कर रहे थे और वो अफसर अभी आ चुका है। जो डैमेज आउटपुट यहाँ पे टीम लिक्विड को पड़ा है, मात्र 2 प्लेयर्स बचे हैं, एक आपके पैंगोलियर, दूसरे आपके इंसेनिया, और सडनली पासे पलट दिए गए हैं क्रैट। थंडर अवेकनिंग ने एक और शानदार फाइट जीती, कर्टसी टू सेक्रेट्स ब्लैक होल अगेन। एंड यस, पज के पास 3000 गोल्ड है जिससे कि वो आराम से अपना ब्लिंक कंप्लीट कर सकते हैं। एंड एक और ब्लिंक उठाया गया अभी, दैट इज टैंगो। आप देखिए यहाँ पे टर्न अराउंड देखिए किस प्रकार से हुआ है। आई मीन मार्सी, ऑल शी हैड टू डू वाज जस्ट गेट बैक, जो पज ने बहुत अच्छे तरीके से किया था। एंड फिर यहाँ पे पज टैंक करने लग गए थे। मिडनाइट पल्स के अंदर फाइट लेना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं था और ये छोटी सी गलती कर दी। बट सीक्रेट कितने अच्छे टाइम का वेट कर रहे थे, सारे प्लेयर्स आए जब करीब, पज ने जब टैंक करना चालू किया तभी सीक्रेट यहाँ पे ठीक जंगल, मतलब जो फॉरेस्ट में थोड़े से हिडन रहे थे, और तब ब्लैक होल चला दी इन्होंने। और इतना बेहतरीन खेला उस मोमेंट पे कि यहाँ पे टीम थंडर अवेकनिंग को अभी भी गेम पे जीवित रखा है। फाइनली पासा पलटता हुआ और थंडर अवेकनिंग लीड लेती हुई 16-15 की स्कोर लाइन। और टॉप यहाँ पे ट्रेड ज़रूर किया है लिक्विड ने, बट इस पॉइंट पे देखना पड़ेगा इस पच का ट्रांजिशन किस प्रकार होता है, क्योंकि धीरे धीरे पच को भी काफ़ी अच्छा फार्म मिल रहा है, यहाँ पे एम्बर को भी काफ़ी अच्छा फार्म मिल रहा है। बट ये सेम चीज़ हम लाइफ स्टीलर के बारे में नहीं बोल सकते। लाइफ स्टीलर के लिए इनको थोड़ा टाइम बाय करना पड़ेगा, लाइफ स्टीलर को अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से पोजीशन भी करना पड़ेगा। यस, तो खूबी आपने बताई बात। पांचों प्लेयर यहाँ पर स्मोक करके निकल चुके हैं, एक मंसूबा दिमाग में लेकर कि कुछ भी करके एक अच्छा इरादा है उसको एग्जीक्यूट करना है। बट सबसे पहले क्रिस्टल मेडन पे डैमेज देने की कोशिश, बट आई डोंट थिंक क्रिस्टल मेडन ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगी। थंडर के जो डार्क मैगो है उनके साइड ऑफ फिश एंड फ्लेम गार्ड के डैमेज से क्रिस्टल मेडन यहाँ पे किक ऑफ हो चुकी है, उन्होंने बाय बाय करके आए हैं। बट ज़्यादा से ज़्यादा वो सेकंड स्किल और फर्स्ट स्किल की मेहमान हो सकती है, बट दिस टाइम दे एलिमिनेटेड द माइटी पज द वेरी फर्स्ट टाइम। अब ये देखिए, आई थिंक दिस एम्बर हैज इशू विद द रेवेनेंट थिंग। लास्ट टाइम भी हमने देखा था उन्होंने रेवेनेंट मार के जाना चाहते थे बट चले कहीं और गए थे। और दिस इज अ टीम फाइट, दे लॉस्ट अवर कोर एंड अ सपोर्ट, बट अभी भी 2-3 प्लेयर्स जिंदा है, जिसमें से एक ऑफलाइन है, एक सपोर्ट और एक मिड है। डायबोलिक एडिट यूज करके शायद से दे कैन टारगेट रोशान, और रोशान लेकर दे कैन मूव फॉरवर्ड एंड टेक टॉप टियर 2 और द मिड टियर 2, जो कि आपको इनको एडवांटेज, जो कहते हैं ना मनी वर्थ एडवांटेज, काफ़ी फायदेमंद है। जी हाँ, और यहाँ पे लेशरैक को मिल जाता हुआ सुनहरा एजेस अभी के लिए थोड़ी देर और धीरे धीरे टीम लिक्विड की जीत के तरफ हम बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। टीम लिक्विड ने काफ़ी अच्छा फाइट लिया था इस बार, एंड आई मस्ट से इंसेनिया का जो रोल हो रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। एंड थंडर अवेकनिंग फेल्ट अनप्रिपेयर्ड फॉर दैट फाइट, ऐसा लगा कि फोर्स हो गया एंड दे वर क्लियरली कॉट ऑफ गार्ड। और एनिग्मा को, इनफैक्ट सीक्रेट को अपना ब्लैक होल का चमत्कार दिखाने का मौका ही नहीं मिला। और टीम लिक्विड इस चीज़ का काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया उन्होंने। अब देखना ये रहेगा कि जो अगर यहाँ पे पिछले फाइट की तरफ नज़र डालें, देखिए काफ़ी बीच में फंस गए थे, इतने सारे स्टन आ गए, फॉलो अप हो गया और वहाँ पे हेल्पलेस हो गए थे मार्सी, एम्बर ज़्यादा देर तक बचने की कोशिश। मिडनाइट, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लिक्विड के प्लेयर्स के जो BKBs हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट। अब यहाँ पे मिडनाइट पल्स का अभी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और इस समय देखना काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। 19-20 का स्कोर लाइन और कैफे लाटे शायद क्रैट की मांग होने वाली है, क्योंकि के अंदर जो वो गर्माहट आती है, वो जान आती है। आज तो पूरा सिस्टम बदल गया, पूरा टोरा सिस्टम फिक्सेस। आप बहुत ही हम्बल और पोलाइट इंसान है और आपकी जो पर्सनालिटी इज़ वेरी पॉजिटिव, एंड भले ही आपके मुंह से फिनाइल निकलता है बट इट्स ओके। बट 1920 का स्कोर लाइन है, एजेस अभी भी 3 मिनट की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। बट लेशरैक
What are his plans right now? He is roaming around the southern area. They are going for the tier 2. Maybe they will. The Radiants will go for the tier 2 also. Trade back करने की कोशिश करेंगे. But I don't think कि एक support Mercy अकेली एक tier 2 tower ले लेगी. But सब ने यहाँ पे rotation start कर दिए. They don't wanna take. They don't wanna let Thunder Awaken to go for that. But ऊपर से यहाँ पर Tusk पहुँच चुके हैं. Leshrac पहुँच चुके हैं. Now they will push top. उन्होंने bottom का ले लिया, top भी ले सकते हैं. Maybe उसके बीच में एक अच्छी fight देखने को मिल सकती है. पांडव ने यहाँ पर tombstone लगा दिया. See, he just melted. He just got melted. अभी देखिए माटू काफी गुस्से में आ गए हैं. But जब तक काला black hole जो है मतलब वो है, you know the rule. Black hole से ऊपर कुछ नहीं. उससे ऊपर तो मतलब गेम में कोई अल्टीमेट आई थिंक एक लोग आए हैं, लोग गए हैं, मेटाज आए हैं, मेटाज गए हैं, बट एनिग्मा 5 तक TI1 से लेके TI11 तक हम देखते हुए आ रहे हैं. गेम चेंजिंग अल्टीमेट एबिलिटी कहा जाता है. और नो मैटर कैसे भी चल रहे हो, कितने हजार की गोल्ड एफिशिएंट हो, एक अच्छा ब्लैक होल पूरी गेम की काया पलट सकती है. और यहाँ पे थंडर अवेकनिंग को कुछ ना कुछ ने पंडारा के पिटारे से निकालना पड़ेगा. और उम्मीद भी एक चीज थी जो निकली थी. और होप वाज द लास्ट थिंग दैट वाज लेफ्ट इन द बॉक्स. जी हाँ, बाकी सब चीजें निकली. लड़ाई क्यों नहीं कर रहे थे? फिक्सेस फाइनली दे आर अप. फिक्सेस बात कर रहे थे ना, तो एंड दे वांट टू फाइट. उन्होंने सबसे पहली चीज क्या करी, उन्होंने पैंडामू का रोशान मारा है, कोरियर मार दिया जिसके अंदर कुछ भी नहीं था. इट वाज एम्प्टी एंड एवरीवन फ्रॉम द थंडर अवेकन दे केम इनटू द प्रीमिसेस जिससे कि कोई नुकसान ना हो सके. एंड थैंक यू स्कॉटन फॉर द लाटे. एंड डिड दे ऐड एक्स्ट्रा शुगर? ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शुगर रहता है. और फिलहाल के लिए आई डोंट नीड इट, दैट्स व्हाई आई वाज कंफर्मिंग. ऑलरेडी काफी चीनी कंज्यूम करते हुए क्रैट अपने कैफे लाते को एक पूरे हफ्ते का वर्कआउट, एक पूरे हफ्ते का वर्कआउट with the amount of Red Bulls that have been consumed last 4 दिन में. जी हाँ, अगर रेड बुल ये देख रही है तो प्लीज डिब्बे भेज दिए. खाली डब्बे भी चलेंगे. खाली डब्बों का क्या करेंगे? इस कबाड़ी वाला गाड़ी वाला है अगर से कचरा निकाल. खाली डब्बे तो कबाड़ी वाले भी नहीं लेते. हो जाएगा. फिर अब एक 5 मैन स्मोक हो गया थंडर अवेकनिंग की तरफ से. हुक्का पी रहे हैं. अब हेस्टून भी मिल जाएगा. दिल्ली में बैंड है. मैं अगर होता तो मैं बोलता पच आप ले लीजिए क्या, बट वो हेस्टून और क्या देता. और वो लेने के बाद उसके बाद जो पच का कहर होता कुछ अलग ही होता. हाँ मतलब आप सोचिए एक पच 522 के स्पीड में आपके तरफ आ रहा है, अब क्या करोगे? बाजू हटेंगे कैसे? देखिए अब लाइफ स्टीलर की भी बीके भी खत्म हो गई है. मुझे नहीं लगता. और खत्म हो गया, अभी तो आया है. मतलब खत्म हो गई मतलब कंप्लीट कर दिया उसको जी. भावनाओं को समझिए क्रैट. अच्छा समझ में. वो आपका अंग्रेजी थोड़ा हिंदी टाइट है ना. वो इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, हिंदी इज सेकंड लैंग्वेज. वो थर्ड लैंग्वेज. You speak 4 languages, right? Second language is Nepali. But फिलहाल यहाँ पे शेयरिंग चेन्स का इस्तेमाल, कूदने का प्रयास, और यहाँ पे वॉल रेस्पॉन्स दे मारा और टस्क को मौत के घाट उतार दिया और खींच लिया इंसेनिया को. फ्रीजिंग फील्ड बारात चलती हुई वहाँ पे और किसी को खरोच तक नहीं आया टीम थंडर अवेकनिंग की तरफ से. दो आई वुड से डिसेंट पिक्स आए. 4-5 उठा लिए हैं यहाँ पे टीम लिक्विड के. और अब जो बचे हैं वो है लेशरैक, फैंगोलियर और लाइफ स्टीलर. अगर इनमें से एक भी आ जाता है आई थिंक कहीं ना कहीं थंडर अवेकनिंग के लिए थोड़े बहुत ऑप्शंस ओपन अप हो जाएंगे. कैन ट्राई एंड गो टू सिक्योर या तो बॉटम टियर 1 या फिर टॉप लेन पे एक पुश एंगेज कर सकते हैं. फिलहाल क्योंकि प्लेयर्स अभी रिस्पॉन होकर आएंगे तो टीम लिक्विड को तो हल्का सा रीसेट दिया गया है. दे हैव बीन पुश्ड बैक. अब देखिए
यू नो विन प्रोबेबिलिटी अभी भी कहीं ना कहीं है। मैच अभी तक हाथों से गया नहीं है। ये देखिए क्या चल रहा है। और ये क्रैट अगर नापाक इरादे दिखाते हुए, और देखिए यहाँ पे बीकेबी भी चला दिया बट कोई फर्क नहीं पड़ता। हुक करके अपने पास करीब बाहों में लेते हुए स्नोबॉल के अंदर ले लिया। आप नहीं जा रहे, आपको हम बचाएंगे, बट टस्क ने अपनी जान गंवा दी। बायबैक जरूर करेंगे बट एक शानदार ब्लैक होल फिर से 2 इंपॉर्टेंट कोर्स को पकड़ते हुए यहाँ पे माटू को इस गेम से कर दिया है बाहर। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है इस गेम के अंदर, क्योंकि एक के बाद एक अब लिक्विड के प्लेयर्स ने भी दावा बोल दिया है। थंडर अवेकनिंग पीछे गिरती हुई नजर आ रही है, और एनिग्मा और अनडाइंग ये 2 इकलौते खिलाड़ी बचे हैं। well, अच्छी कितनी देर तक ये दोनों खिलाड़ी बचे रहेंगे? फिलहाल करने के लिए तो कुछ है नहीं। अगर हल्की सी भी भूल चूक करी तो टीम लिक्विड बहुत ज़्यादा बड़े डेफिसिट पे इनको धकेल देगी, एंड दैट इज जस्ट गोइंग टू मेक द एंटायर सिचुएशन वर्स। तो इसलिए बैक ऑफ करते हुए हमें नजर आएंगे। लिक्विड ऑन द अदर साइड अपनी वेव्स पुश करेगी और थोड़ा सा प्रेशर इन टियर 2s के ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करेगी जो बचे हैं यहाँ पे थंडर अवेकन के इन मिड एंड इन टॉप। Krat, are we still rooting for Team Liquid? या हम पार्टी बदलें? I'm stunned. I don't know, man. This Secret is so obsessed with the core ones. हर बार black hole के अंदर माटुम्बा होता है, and I don't like this. I don't know what happened. इतना अच्छा गैंग होने के बाद सब मर कैसे गए? Pudge died, and it was Leshrac. The main culprit behind their deaths is Leshrac, because the magical damage coming out from this person is immense to handle. So luckily, okay, nice item. BKB, Scythe of Ice, and Bloodstone, and POTs, and Flings, and Magic. I will miss my reflection. Krat जो लाइन थी, I don't know man, ये एक लेजेंडरी शख्स के वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे लिक्विड ने जी किस तरीके से मेल्ट डाउन कर दिया थंडर अवेकनिंग के प्लेयर्स को। एम्बर स्पिरिट, अनडाइंग और मार्सी तीनों वापस अपने फाउंटेन की तरफ अभी वेट करना पड़ेगा अगले 50-60 सेकंड का, क्योंकि ये एक अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। पच को बैक ऑफ करना पड़ रहा है। आप देखिए एम्बर ने अपनी बीके भी चला दी। इस समय इस दौरान काफ़ी ज़्यादा डैमेज ऑलरेडी पड़ चुका है। टस्क को कितने देर तक जीवित रह पाएंगे? ज़्यादा नहीं इज गोना बी द आंसर। और उसी के साथ माटू भी गिर चुके हैं। यहाँ पे एनिग्मा का मिडनाइट पल्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया है, और वहाँ पे पैंगोलियर दुम दबा के भागने की कोशिश, बट यहाँ पे थोड़ी परेशानियों में फंस सकते हैं जाए, और यहाँ पे उनका भी पिक निकाल दिया। सडनली ये मैच का रुख पलटता हुआ। so annoying. पज मरने का नाम नहीं ले रहे हैं। The next item पज की लिस्ट में वो है, that is what's that? That item is शिवाजगा। बहुत ज़्यादा टैंकी हो जाएंगे। पज के पास बायबैक भी है, so they should be out. अच्छा फ्रेश गोलम ऑन है मैंने, that's why like giant ring इतनी जल्दी कैसे आ गया? So he used his ultimate on Mickey. He had the TP instant. Oh my god, this rot is next level. I think Scepter के बाद rot का भी डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, and it's not bearable. और ये देखिए Matumba tried his best, but एक sleight of his I thought like that must be the real reason behind his fall. और अब Leshrac भी कितनी देर तक अपनी खैर मनाते, and वहाँ पे DK भी concentrate चल रहा था, and this rot is giving lot of damage around. अब कैसे आगे बढ़ेगी? बिकॉज 2000 नेटवर्थ अभी भी है, बट लिक्विड के चांसेस है, बिकॉज ये ब्लैक होल है जो सारी गेम उनकी ख़राब कर रहा है। जैसे ही ठीक होगा या ब्लैक होल से कुछ प्रॉब्लम होगी तो बेटर हो जाएगा। यहाँ पे आई थिंक अब प्रेशर बनाना चाहेंगे टीम थंडर अवेकन। जिस तरीके से अपने आप को संभाले रखें इस गेम में, क्योंकि अब हम धीरे धीरे जा रहे उस लेट गेम की तरफ। और जाई के लेशरैक के लिए कोई कंप्लेंट्स नहीं है अभी तक, मतलब कंसिडरिंग लेश खेल रहे हैं, ही इज डन प्रीटी वेल।
शुरुआत में इंसेनिया ने भी काफ़ी अच्छी मदद की थी, बट जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया कहीं ना कहीं उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम होती गई। 5 मैन स्मोक यहाँ पे टॉप डायर जंगल के अंदर जाते हुए इंसेनिया को स्पॉट किया, बट उनसे ज़्यादा वैल्यूएबल है ये मार्क 2। बट ये देखिए यहाँ पे इंसेनिया तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ हुक कर दिया है और मार्क 2 यहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे। एक और ब्लैक होल आता हुआ है, 2 प्लेयर्स को अपनी चपेट में लेगा और यहाँ पे दुम दबा के भागने की कोशिश करने वाले हैं मीके। और यहाँ पे हुक अगर लग जाता तो शायद माजरा कुछ अलग ही हो सकता था। उनको काइट करने की जद्दोजहद कोशिश, बट ये एम्बर भी उनके पीछे तुले पड़े हैं और 4 प्लेयर डाउन हो चुके हैं। एक बहुत ही शानदार गैंग यहाँ पे, शानदार फाइट थंडर अवेकनिंग के प्लेयर्स ने ली है और इसी के साथ शायद यहाँ पे सपने ज़रूर देखना चाहेंगे कि ये जो टियर 3 रैक्स है वो अपने वश कर पाएँ। बायबैक्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो क्रैट ऐसा लग रहा है कि थंडर अवेकनिंग के प्लेयर्स जीत के काफ़ी करीब हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब प्रेडिक्शन हो रही थी गुप्ता जी पूछ के गए थे तो आप लोगों ने टीम के कौन से नाम दिए? टीएल मैं तो थंडर अवेकनिंग। मेरा तो कोई मान धरम नहीं है, मैंने तो देख लिया कंफर्म शॉट। देखिए हम अरे बच्चे भग गए, धर्म से वंचित बिल्कुल नहीं है। मिकी, where are you going, मिकी? Come back, they miss you. इससे टीम लिक्विड बोला था ना? हाँ, हाँ, ये भी गा रहे थे। झूठ बोल रहा है और मैं अकेला था जिसने थंडर अवेकन बोला। ठीक है। रैक्स मिड पे जा चुके हैं। न्यू इट कि ड्राफ्ट में ऐसा कुछ। वैसे आप भी लिक्विड का गाना गा रहे थे। वो तो तू कर रहा था और आई एंजॉय डूइंग दिस स्टफ। मैं तो अभी भी कहूंगा लेट्स गो लिक्विड, बिकॉज़ अब देखो गेम जो हार रहा है, यस, उसको जिताने में मजा आता है। ऐसा तो नहीं होता क्रैक। कम ऑन द फॉर। ओके, सो थंडर अवेकनिंग के पास अब आ चुका है एडवांटेज अच्छा खासा, 5k गोल्ड एजेस ऑन दैट एम्बर स्पिरिट। बट टीएल के प्लेयर्स रिस्पॉन होकर वापस आए थे, तो थंडर अवेकन अब खुद को एक रीसेट के लिए लेकर गई है, वापस फॉल बैक किए हैं अपने मैप के अपने हाफ की तरफ। मज़ेदार बात यह है यहाँ पे टीएल के वार्ड्स प्लेस्ड हैं, अगर आप नज़र डालें मैप पे टुवर्ड्स वेल द साउथ ईस्ट एंड टॉप लेन के पास, तो थोड़ी सी इन्फो यहाँ पे टीएल के पास आती रहेगी एज टू वेयर द प्लेयर्स ऑफ थंडर अवेकन आर हेडेड। बट टीएल के 2 प्लेयर्स इसी साइड पे जंगल के लर्क करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और अगली जो फाइट होगी अगर उसमें टीम लिक्विड हारी तो वो इस गेम की आखिरी फाइट हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल, और इसकी शुरुआत भी हो गई है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इनिशिएशन मार्सी के ऊपर, बट यहाँ पे एम्बर भागने में सक्षम। बट ये जो इन्होंने डाला था बड़ा आइस का क्या डालना, आइस का एक बर्फ का एक रास्ता, आइस शार्ट्स बोलते हैं ना? नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं? पिगलू। पिगलू नहीं होता। क्या होता है? इग्लू होता है, बट वो इग्लू अलग है। वो आधा इग्लू, कटा हुआ इग्लू। कटा हुआ भी नहीं है, वो एक सेट आता था, मतलब उससे वो होता फिक्सेस था। जैसी बातें करते हैं ना, और जो जो इनके पॉजेस के मोमेंट्स होते हैं, किसी दिन किसी गलत जगह पे बहुत पिटेंगे। आपको आप एक बात बताओ, आप अपने सेंटेंसेस फिक्सेस पूरे किया करो, पहली चीज तो है आप नहीं। पंक्चुएशन सीखो। Fixes, सुनिए। I think we should focus on this game. This game Yes. already on the 40th minute game. अब हमारा tier 4 भी आने वाले items, so it will look good. अब ये देखिए इनसे अकेले खेल रहे हैं और इनको पता नहीं चलेगा कि, और देखो टाइमलेस सेलेक्ट, गुड आइटम ऑन पज, पज मेरे ख्याल से टाइमलेस सेलेक्ट यूज कर सकते हैं। और स्टॉर्म क्राफ्टर टेलीस्कोप मेरे ख्याल से यूज आ जाएगा। मार्सी शुड यूज टेलीस्कोप बिकॉज कास्टिंग काफी दूर से डिस्पोज कर सकते हैं वो। और एम्बर के लिए स्टॉर्म क्राफ्टर है, बिकॉज अगर कोई साइलेंस वगैरह होता है देन वो डिसेबल डीबफ कर देता है। क्राउड, अब मेरा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस सर। अभी हमने थंडर अवेकन का कमबैक देख लिया, दे आर डूइंग रियली वेल फॉर देमसेल्व्स। अब लिक्विड का नहीं आता, वही मैं पूछ रहा हूं। देयर इज नो आंसर टू ब्लैक होल एंड सीक्रेट। देखो जब तक कहते हैं ना, एक सवाल का जवाब बड़ा सिंपल है इस गेम में। थंडर अवेकन के लिए एनिग्मा का ब्लैक होल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ब्लैक होल नहीं लगता है तो लिक्विड को कोई हरा नहीं सकता। अरे देखिए इस बार उन्होंने वही कोशिश किया है, सीक्रेट के ऊपर डायरेक्ट चढ़ गए, बट यहाँ पे मौत के घाट इनको उतार दिया।